Hey guys, good evening. Just give me 1 minute. We'll start. All right, so let's start. Okay, let me share my screen and we can start. All right, so just wait a couple of minutes because more people are joining. So once people will join, we'll start the session. So when we'll just wait for the few minutes, we'll start the session. Okay, just a couple of minutes, then we'll start. So just wait. I think, let me see. Okay. Just use this navigator here. Okay. Okay, so thanks everyone for joining this session. Okay, let's start this session without any further delay. Okay, so welcome you all in the GuiNet technologies, and today we are going to like start or demonstrate the Palo Alto firewall session. So we'll try to understand the basic stuff of the firewalls. We try to understand about the security. Let me mute somehow. It is played in some other device. So we'll try to understand the firewall fundamentals, right? And the security concepts. We also understand why we need to do the certification for that particular Palo Alto firewalls or any other security firewalls, right? So the session will be then in Hindi and English. So because this is the open session for everyone, so we'll try to understand in the English today. But in upcoming days, when we'll start the session, based on your choice, whatever you guys want, we can go with the Hindi or English. It would be like the miss kind of the situation. So whatever you guys feel like it's more comfortable, we can go in that language. Okay. So I hope it's clear to you all, right? So we are the GuiNet like technology. We are dealing with the different technology like Cisco, Versa, Zscaler, Palo Alto, Checkpoint. So every technology we are touching, routing, switching, whatever you want to learn. So if you having any requirement training, so you can reach out to us. You can reach out on these numbers. You can visit our website. You can write an email. So definitely someone will connect and definitely help you out regarding your queries. Okay. So moving next, without any further delay. The first question might be coming in your mind, why should I start learning with the Palo Alto Firewall? Because you might have doing some kind of the networking jobs, you might have doing some kind of the other jobs, not networking or basic networking, or might be the IT administrator job. So why you want to learn the Palo Alto Firewall? This is the first thing you just have to understand. And what is the Palo Alto Firewall and what is the firewalls? Why we need the Palo Alto Firewalls?
or like the any other firewalls why we need. So we try to understand those all query answer during today's discussion. Also, we'll try to understand what is the security, right? And why we use the security concepts. And while doing this Palo Alto, what benefits we are going to get in the upcoming future careers. So this kind of the concept we'll definitely try to understand and try to get during these 2 day sessions. So let us start. So if I talk about the Palo Alto firewalls, so likewise in a market, we having a multiple firewalls. In a market, we having a multiple firewalls. So if I just classify the firewalls, so firewalls having a lot of vendor, like the Cisco is the one of the vendor who basically design or develop the ASA firewall. Similar, we having the Palo Alto firewall. We having the Checkpoint firewall, right? Checkpoint firewall. We having the FortiGate firewalls, FortiGate firewalls, right? So this is also one of the firewalls. We having a Shopos firewalls, right? We having other vendor firewall like some virtual appliance firewalls also available in the market, but these are the leading firewalls available in the markets, right? And in addition of that, if you are using the computers, that computers also having some firewalls already configured there. Likewise, if you talk about in window, we having the inbuilt firewall, that is a software based firewall, and this software based firewall also basically going to protect from any kind of the threat, malicious communications, or any kind of the port protocol, source and destination IP. If you want to block, that is also possible. So if you see in my particular computer, and here you want to check, you having the defender already available, that is known as the window firewall, which is known as the window defender firewall. And in this firewall, if you want to keep the policy, if you want to keep the rules, that is absolutely possible. Inbound rule, outbound rule, everything is available. So by default, most of the things are allowed, all traffic communication is allowed. But if you want to block anything, it is possible, we can block it, we can modify it. See, we having the allow and block. So we having the similar policy available in this particular firewall also, which is my computer itself. So firewall basically it is available almost everywhere. Either you working on the local computer, either you working in the any networking concepts, any networking device, or might be your company is small, large, or the largest, everywhere you'll find the firewalls is available. So basically, once we and before we go and understand the firewalls, we have to understand, let me mute, we just have to understand, if we starting the career with the Palo Alto firewalls, so what are the different like we having the options available in the Palo Alto sectors. So in Palo Alto Education Service, this is the official website of the Palo Alto. And if you go here, so in this particular official website, you having a lot of certifications. So you might find the some certification related to the Prisma, certified cloud security engineer. So this is for the cloud. You having some kind of the certification that is related to the might be for your cloud security, network security, and some cyber security. So still we are very confused. Means many people are very confused. What is the cloud security? What is the cyber security? And what is the network security? And after doing the Palo Alto firewall, which part I'm going to cover it? So this is the like $1,000,000 question might be coming in your mind. So let me just clarify these all things. So in Palo Alto official certification, we having a lot of certifications. It is related to the Prisma, that is part of the cloud security. It is related to the cyber security. You can see we'll find the cyber security also. So these are the cyber security fundamentals, SASE solutions. These are the common the cyber security. Also, most important, which we are going to cover, that is the network security. So if someone is going to ask, what is the cloud security, what is the network security, and what is the cyber security? Okay. So to understand this, all three framework, we just have to understand the basically the security infrastructures modules. So we having a 3 modules in security infrastructures. Let me write it here. Let me just put the pen this side. So in this particular domain, we having a 3 security. One is the cyber security. Let me use some different color.
So we having a cyber security, right? We having a network security. We having a cloud security, and we having the information security. So now in the security itself, we having the 4 flavors. So which one I should learn? Shall I start building my career in the cyber security? Shall I start building in my network security? Shall I building in the cloud security? Shall I building in the information security? And what does mean by the cyber security, cloud security, network security, and the information security? So these are basically all part of the security. These all 4 fundamental is a part of the security. So in security, what do you think in real life scenario? You find a lot of type of security. One is the physical security. So if you go in your office or any any kind of the location like public place, you'll find the physical security. What is the physical security? Physical security like security guards, right? You having the CCTV cameras, right? You having the scanners, and etc. So these are the part of the physical security. Means they are going to view and verify before you just reach, or might be you just have to cross any kind of the public location like metro, railway stations, might be the airports, or any kind of the malls. Similar, if you are going in the office, might be the security personnel before you entering the office, they are going to check your ID card, or might be you have to put your access on the front of the gate, and you are able to authenticate by the access controllers, then only you are allowed to go inside the office. So this is the physical security. The physical security could be the security personals, could be the CCTV, could be the scanner, could be there might be your like punching machine. So to just ID card punching machine. So these are the physical security. The second one is the logical security. So what is the logical security? So if I talk about the logical security, how it is going to helpful for you. So logical security having like there is no physical presence available in the in you cannot see that security. You can see the devices. What are the devices? You might be see that the devices which is known as the, let me just write it here. So you might be see the router, you might be see the switch, you might be see the firewalls, right? You might be see the servers, right? You can see the WLC, you can see some kind of the PCs, laptops, printers. So these might be the different network devices. These are the physical devices. But if you want to achieve the security inside this particular physical devices, you need some concept that is known as the logical security. So how this is going to provide the security? So basically, let's assume that this is your office. This is your office. Let me just draw by this. This is your office, right? Let me see. Let me mute. So this is your office, and this office we might having a 2 gates, right? So one gate could be this one. Why my pen is not working? Let me see what happened. Just give me 1 minute. Anyhow, not working, leave it. So might be having this one gate. This is one gate, and another gate would be this router. Guys, please mute yourself. I can see someone is speaking, so you can mute yourself. So this is your might be the router, okay? So this is the R1, and this is your entry gate. Entry
or exit gate. This is connected with your internet. And this is just something as a gate where we can entry or exit from this particular gate. So let's say suppose you coming from this gate to inside of your office. So might be different workstations available here for the different sections, and you have to sit there and you have to work. So you coming, and while entering inside office, you just have to prove your physical security. You are actually authorized to go inside of the office or not, or if you are authorized to go in office, which department you should go, right? So every department having their own gates. So might be there is 3 departments. So might be once you pass the main security access from here, you again have to go and punch your card and you have to go inside of this particular cubin, yeah, cubicles or whatever the private area for your particular branch. Then you are good to go. So this is going to check with the physical security. Now you are inside of this particular office and you are connected with your PC. So let's suppose this is your workstation and PC. And now from sitting in this PC, you wanted to access the internet. You wanted to access the internet. And your company is saying, if you are sitting in this particular domain, you wanted to access the internet, you should not access the YouTube. You should not able to access. Let me mute, guys. Let me mute. So there is a concept, you could not access the Facebook, you could not access the YouTube. So how basically you are going to protect that? Because you having a simple router, this router is connected with the internet, and then who is going to prevent that? So if you want to do the blocking based on the PC, it is going to very complex, because PC also having the firewalls. If you want to do the on router, it is again very challenging for you, because the YouTube, Facebook IP keep getting changed. So we having the limited scope to apply the ACL and block the connections. So again, there is a problem. So to mitigate this problem and allow the limited internet access or the complete policy access, whatever you want to allow, you have to introduce the new firewalls, new appliance, which is known as the firewalls. So we might be we just have to introduce the device which is known as the firewall. So probably I'll go and I will just use, let me just use some different color. So let me use this one. So I'll use a device in between these two and I'll name as the firewalls. So this is my firewall device. Okay. So now this firewall is acting as again a gate, which is the physical gate, and this is going to, this could be the physical device, this could be the logical device. But when the traffic is going to process via this firewall, so based on your user IP address, user name, or whatever the department, it is going to check whether you are allowed to access the YouTube, you allowed to access the Facebook. If you are not allowed to access the YouTube or Facebook, it is going to block straightforward here. But if you are allowed to access, it is going to allow the access, and it is going to allow the access the internet. So that means whenever you go out or anything coming in, this firewall is responsible to provide the logical security. So again, you are leaving your company, but gate is different. It is the logical. You are going via the internet out. You are doing some logical steps, right? And one is the physical steps. You are just moving around physically inside the office or outside the office. So it is a physical step. So you have to be very careful while understanding the physical security and the logical security. But security is going to be always. So if you talk about the security, this security is going to basically apply for the physical security and logical security. This is just overview I'm giving you. So just you understand how securities looks like. Okay. We'll do the deep dive, how the firewall functionality is going to happen, how it is going to block, and everything we're going to do that. But this is just overview sessions. We are just building the concept, how security, what is the idea behind it, and how basically it is going to game changer for everyone. Okay. So now moving to this section.
So now security having a two part, physical and logical security. Then what is the use of the cyber security, network security, cloud security? So if you talk about the cyber security, network security, and cloud security, these are the all security which is just managing the logical security parameter in different domains, different domains. But when I talk about the information security, when I when I call to information security, it is just going to manage the physical security plus logical security both. So information security is the bigger word in compared to the cyber security network, cyber security and the network security. So if you just focus about the information security, that is just going to completely deal with the physical security and logical security. But if you deal with the cyber security, network security, cloud security, this is just limited to the logical security and it is limited to the specific domain. So let's understand one by one what is the cyber security. Okay. Sorry, what is the information security? So a little bit we'll understand about the information security, why we need the information security. So if you are going for the any security certification or like the CCISP certification, these all terms are going to be very useful for you, and they are, trust me, they are very, going to be, help in terms of the doing the audit and the managing the network and everything. So information security is measured to taken care everything unauthorized entry. So physical security unauthorized entry could be the logical entry from the internet or might be the your physical. It is going to just check everything. It is also check the cloud security, network security, and cyber security. All parameter it is going to check. It is also deal with the data. It is also deal with the threats. It is also deal with the any unauthorized access, any data leak. It is also try to maintain your data confidentiality, integrity, or availability. So that means if you want to deal with the information security, everything from your company point of view should be, very secure in terms of the physical security guards, in case of the access of the buildings, in terms of the parkings, if you think should be very well precised and very well allocated and nobody can, do any unauthorized stuff there, in terms of your routers, switches, your data, your assets. So it is going to give the everything like how should be managed. That is the information security. But if you talk about the cyber security, so cyber security is limited to the cyber security domain. So what is the cyber security domain? So that is cyber attacks, cyber frauds. You might be heard about that. So might be nowadays we having a lot of cyber attacks, cyber frauds where people are just getting money from the different tactics, phone pay, paytm, google pay, and other website that they're using, right? So if we want social engineering, they are doing based on social engineering, they get some your information, and based on your information they will hack your websites, brute force, patting, ransomware. So these are the terms. Basically cyber security means they are trying to hack or destroy your network. They will try to destroy your business by using some, naughty tactics. So that is going to part of the cyber security. So cyber security basically is just, protecting your network by, not happening any fraudulent through the your network areas. जो भी आपका नेटवर्क एरिया है उसमें किस तरह कोई फ्रॉडुलेंट ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी. लेकिन साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए whatever you want to learn about the cyber security, you should know about the network security. So what is the network security? Network security is the backbone for the every security. If you don't know the network security, it is hard to digest the cyber security. It is hard to digest the cloud security, and also it is hard to digest the information security. Because information security will give the overview of the every security, but anyhow you just have to understand your networks, your firewalls, how they protect your all the resources, how to protect your data. So network security, that means whatever the routers, switches, firewall, server, WLC, PC, printers, etc., whatever devices you have, if you want to protect them, then basically you need the network security, and without network security you cannot protect them.
And once you create the network security protections, it is very easy to even defend the cyber security. Cyber security is also going to be, some tools are going to be add on, but concept is going to be leveraged from the network security, and based on leveraging those concepts, you are going to use those concepts and you can apply the cyber security and you can learn very easily cyber security. So these are the interrelated to each other. What is the cloud security? So cloud security is nothing. It's similar to the network security, only the change is going to happen. Might be your devices are hosting in the on premises, means your data center you managing, your office network you managing, everything. But once you move your data center in cloud, so your server will move there, your database will move there, your application will move there, your router will move there, your switches will move there. So again, in need of firewalls. So it could be the cloud-based firewall, like the Azure firewall, might be the Palo Alto firewall, might be the Checkpoint firewall, ASA. These are the virtual firewall. So the functionality will be the same or similar, I can say, or might be a little bit advanced, but the concept again from the network security. This is the backbone of the every security platform. So if you want to learn either the cyber security, cloud security, information security, you should must know the network security. And network security is nothing. This is your firewalls. So if you see here, I hope you understand this particular concept. Anyone having any question till now and want to ask? Anyone just want to anything? What is cyber security, network security, cloud security, information security? Yeah, everyone is very clear about it. If you have question, please feel free to ask. I'll definitely help you out to understand that all. Okay. So moving next, okay. Don't be hesitate. आप लोग हिंदी में पूछ सकते हो. I'm very comfortable. And अगर इंग्लिश में पूछना है तो इंग्लिश में पूछ सकते हो. जिस तरह से आप लोग समझ में आया आप लोग पूछ सकते हो. बिकॉज से ओपन सेशन, सो मैं इसको आज थोड़ा इंग्लिश में डील कर रहा हूँ, बट आप लोग जैसा कंफर्टेबल समझो, इट्स ऑल फॉर यू ऑल. ठीक है, so आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू गैस कैन आस्क एनीथिंग. सो अगर मैं पोलो अल्टो में जाता हूँ एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेटवर्क सिक्योरिटी. सो यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारे आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी के फायरवॉल्स के बारे में आपके पास कुछ कुछ मॉड्यूल्स आ रहे हैं. जैसे पोलो अल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंजीनियर. सो दिस इज द सॉफ्टवेयर फायरवॉल, नॉट अ हार्डवेयर फायरवॉल. So again, it is going to use in the cloud infrastructures. फिर आपके पास दूसरा है जो PCNSA जिसको बोलते हैं, Palo Alto Network Certified Network Security Administrator. That is intermediate levels, right? This is advanced levels, and this is the Palo Alto Network Certified Security Engineer. That is a PCNSA. This is again advanced level. So in this particular module, when we are going to talk about the network security, we'll cover the two particular levels, that is a PCNSA and PCNSC. Both we are going to cover, and we'll learn entire complete how firewall is going to be configured, how can be deployed, what is the different use cases, and सारे feature को हम इसको explore करेंगे. That is known as the network security. So अब मैं अगर जाता हूँ down the line and we talk about the Palo Alto product portfolio. So again we having the strata, that is a completely network security. इसके अंदर आपकी जो firewalls हैं, that is a VM series firewalls or CN series firewall, that is a hardware. Panorama and the Prisma access is just for the SASE cloud based firewall, secure access services. This is the cloud solutions. So इसके अंदर you get the SD-WAN solution also, Prisma Access SASE solution. अगर Prisma आपको firewall चाहिए cloud based, वो भी आप integrate कर सकते हो. And the Cortex XDR is just for the inside monitoring and visualize the network कि कैसा network मेरा perform कर रहा है, what is happening inside my network. So if you want to visualize your network, you just have to use the Prisma Cortex XDR. So this is a tool, you can say that, for the monitoring purpose. But these are the two solutions, one for the cloud SASE solution, one for the enterprise firewall solution, that is for the network domain. So in this particular module, we are going to discuss more about, and I can say everything about the firewall, which is a network firewall. And this is the Palo Alto firewall. This is a completely separate module. And this is the SASE solution. And this is the, again for the monitoring and troubleshooting tool. So we are not going to touch these two modules. Yes, if you're having any question, you want to ask a specific question, come to me. I have the good understanding. I'll definitely help you out.
but we are not going to touch entire because these are the different modules. So SASE having a completely different module, and we are going to just talk about the PCNSA or PCNSA. These two syllabus we are going to cover. So after this particular module, you will be eligible to do this certification and this certification. I would not recommend it to do this certification because just waste of money. If you're well prepared, go for the PCNSE certification and become the advanced engineer, Palo Alto Network certified network security engineer. So this is your certification part after this particular course curriculum. So I hope it's clear all what is a network security, what is a cloud security, what is the information security, and what is the cyber security, and what we are going to cover in this particular module. Okay. Now, question might be come in your mind, why we should do the Palo Alto certification. This might be coming in your mind, why we should do the Palo Alto certification. So see, in market, we having a lot of vendors available who providing the firewall solution. You can see Cisco, we have the Alibaba, we having the Microsoft, we having the Juniper, Huawei, Amazon, H3C, might be you not heard, Sonic Wall, Shopos, Cartoon Network, ForcePoint, Barracuda, Versa Network, and also we have Palo Alto, FortiGate, and Checkpoint. So some are the challengers, some are the leaders, some are the niche players, and some are the visionaries. So who most important for every organization? Leaders, everyone wants. Everyone love leaders. Good leader, everyone wants. Like, so if I'm the leader and if some company needs some kind of the services from similar to me, I'll go and tell them, hey, I am the market leader. If you take the services from me, you'll get the world best class services. So these are the three firewalls, Palo Alto, Fortinet, and Checkpoint. They are the market leading firewalls. Either of the firewall, if you're doing, you'll get the equal opportunities in a market because almost everyone having the similar client base available in the market. But even in the leaders, Palo Alto is leading the leaders. They're having the very high demand and very easy to learn the firewalls. Palo Alto very easy to configure, very easy to troubleshoot, very easy to learn. So one of the easiest firewall I can say, or one of the means most popular firewall, easy and most popular and very easy to implement and troubleshoot, that is the Palo Alto firewalls. So that's why Palo Alto having the very high demand in terms of the customers. So if customer are ordering more and more firewalls, they also need more and more engineers to support them. So that's why we having the very high jobs available in the markets as well. So if you are going to learn the Palo Alto firewall, there is a high chance you'll get the more calls for the interview and you'll crack the more interview and you'll get the more jobs, or might be you can negotiate for the more money. So it's all option available for you. I'm not saying the same time Fortinet not have, definitely it's have. It's also very good firewall. Checkpoint also very good firewall. Even Cisco is a good but very less demand in the market. People are more in the Fortinet, Checkpoint, or the Palo Alto. So but Palo Alto is like very popular, I can say, very high demand in the markets. So this is the one reason you should learn the Palo Alto firewall. What is the second reason you should learn the Palo Alto firewall? So this is the like one of the like esecurityplanet.com. This is the open source which just doing the survey, like which firewall which better, which is like not better, what is the feature, like you purchasing the mobile or purchasing the car. So before purchasing mobile and car, you go like GSM Arena for the mobile comparison, like you just want to compare which mobile is better and why should I purchase. So you can check the pricing, you can check the features, you can check the like processors and the storage and battery. Then you come to know these two phones having the similar features, but this phone having the lower price. So once you find this phone having a lower price and equal features, then you go for that phone which is having the lower price. But if you want to go with the brand value, even the price is high, you can go and buy the brand. Like there is two phones, one is the Samsung, one is the Apple, and both having the similar feature and equal price. Definitely people will choose the Apples, or might be 1,000, 2,000 is extra, and still people will choose the Apple. So this is how basically it is going to be happen. So it like total mind game, you what Pocket is allowing. So similarly, Planet is also doing the same stuff.
in this e-planet security planets, they compare the firewalls like Checkpoint and Palo Alto firewalls, Palo Alto and Cisco firewalls, Fortinet and the Palo Alto firewall with a different parameter. I mean, security performance, value for money, implementation, easy to implementation or management, how it is, support, how the tax support is available, and cloud features. So they compare different parameter with the different firewalls, Checkpoint and the Palo Alto. And you can see here in basically point based, very good and fair. So in security performance, Palo Alto is the best and Checkpoint is the very good. So still Palo Alto is leading here in security performance. So what is security performance? How they are performing the security checks while coming any packets inside the firewall, how basically they are performing the security checks. So this is the security performance, right? So similarly, if we check the value for money, so this is the fair, but this is the good. So it is again cheap for you. So if you are going to purchase, you are going to invest, it is going to again good deal for you, and it is going to always help you on top of the save the money, right? Next, for the implementation. So I said, right? Just give me 1 second. So likewise, I said implementation. So Palo Alto is very easy to understand, very easy to implement, and it is like, you can quickly understand. So you can say both implementation are very, best. Why? Why they both are best? Because earlier Checkpoint, the founder of the Palo Alto Firewall was working in the Checkpoint, and after leaving the Checkpoint, he created the Palo Alto Firewall. So see here, so the history of the Palo Alto network is an American multinational cyber security company that is head office in the California. His Nirjuk is the founder, right? Former engineer the Checkpoint and NetScreen. So he left the Checkpoint and he created the Palo Alto Firewall. So almost if you understand the Checkpoint or Palo Alto or vice versa, you quickly understand, like Palo Alto, you can quickly understand Checkpoint. You know Checkpoint, you can quickly understand the Palo Alto Firewall. This is another benefits. So both GUI is look similar, both way of the configuration is look similar. Only few differences you will going to find in terms of the features, which is having the more feature in the Palo Alto Firewall, having the less feature in the Checkpoints, right? So I hope it makes sense to everyone. Now moving to the next one, that is the management. So you can see again, because both of the origin is the same. So again, management is the similar, easy to manage, easy to troubleshoot, but support, see, Checkpoint having the very bad support, but Palo Alto is a very good tag supports, right? So this is again new feature you can see. So here Palo Alto is leading. Similar the cloud feature you can see, cloud feature, Checkpoint is leading. They having the very good cloud features, but Palo Alto somehow is lacking. So if overall you compare, in some field you find the Checkpoint is leading, some point you find in the Palo Alto is leading, but majority of the point you see Palo Alto leading, just Checkpoint is leading in the one point, that is a cloud feature. But rest of the things you can say here it is leading, it is also leading, they are the equal. So I can say Palo Alto is a win in terms of the overall comparison with the Checkpoint. Similar, if you see the Cisco and the Palo Alto, many sector you will find the Palo Alto is leading and Cisco is very lacking. That's why Cisco having the very less demand. Fortinet, again, see, Fortinet is value for money, security performance very high. Palo Alto is low here, but again, these two things are leading and these two things are lacking here. So if you compare, these are the equal. So this is again leading in two sections in compared to Fortinet. So again, Palo Alto is having the high demand. So the cut and short story is in two source of the two source of the comparison. If I going to do that, that is the one is that is the Gartner report. Gartner Magic is the open source network firewall, which yearly based doing that comparison. They are we are going to basically understand the Palo Alto Firewall is leading, and the second one is again the e-security planning. It's also helping me or you all understand. You can visit this website anytime, eplanetsecurity.com, and you can see that comparison. The Palo Alto is leading everywhere. Now I have the question from Saurabh. Sir, we'll cover the both Palo Alto Firewall part. Yes, so Saurabh, we having these two scenario, that is the PCNSA and PCNSE. We are going to cover entire
PCNSA and PCNSC in this particular session, right? Any other question, guys, till now about the modules, about the strata, about the Prisma, about the Cortex XDR, about the security, about the Palo Alto, why should learn, and the history of the Palo Alto. Again, you can see the near juke Sir, in the. could you share a syllabus for both? I'm coming to syllabus only after that, so you'll understand the syllabus. Okay. So if you go for the syllabus point of view, so unofficially you'll find the syllabus on the website. So if you go here and you will see here PCNSA, learn more. If you click that, so you'll find the complete syllabus here. So you have to understand next generation firewall setup management, connection, zone security policy, protections, app ID, block threat, wildfire versus malware. Just understanding. You not have to do a lot of labs. It's very limited. You can say course content are available in the PCNSA. But if you go in the PCNSC, in PCNSC, you'll find a lot of things here. This is PCNSC, right? So if you go and learn here, so PCNSC, you'll have more like node security policy configuration, DOS management, app ID, block threat, formation, panorama understanding, device template, device. So everything. So if you club these all, it is going to become this particular course content. If you club both, you are going to become this particular content. So total 12 content we are going to understand. So let me just quickly brief that what we are going to understand after this particular course. So we'll start with the module 1 and we'll complete total module, that is a 12 module we have in this particular Palo Alto, which is going to cover PCNSA officially and PCNSC officially. None of the topic is going to be left. So you will get very inside view, everything about the Palo Alto firewalls. You understand about the platform and architecture, that is the single pass architecture with the parallel processing. This is a very interesting and unique feature in the Palo Alto. You are going to understand the packet flow, how the packet flow is going to happen step by step, how the ingress packet is going to land, and how the egress packet is going to leave from the firewall, and in between what is going to happen, how the NAT, security, slow path, fast path, app ID, content ID, user ID, how the application ID, these all comes in a picture. Decryption is going to come in a picture. So these all we are going to understand the packet flow in very deep type. So this is the in first module. So you'll understand about the architecture of the firewalls. You'll understand the packet flow. Then we'll go for the initial configuration. We'll understand how to configure the brand new firewalls. So likewise, you can see this is one of the firewall. This is the configure firewall from the previous batch. So 78 is the IP. Let me just log in it. So just I'm showing. So this is the firewall. You can see actual firewall on which we having a 2 series of the firewall PAN OS 9.0, 10.0. So both we'll cover in this particular session. So I'll explain how the from 0 we can configure scratch. We'll configure this particular firewall. And while doing the configuration, what steps we have to follow, and step by step how the understanding is going to be happen. So this all we are going to understand in this particular. See, this is the firewall dashboard. You can see a lot of SEC command center monitor. We have in the objects, network, devices. So a lot of information we have. So we just have to understand one by one each and everything. So we'll start with the platform and the architecture. It's more about the theory. You just have to understand. We have to understand about the packet flow. Again, it's a theory, but we'll understand deeply how the packet flow is very relevant in the Palo Alto firewall configuration. So I will show that level of the information, so you'll get that understanding. Then after this initial configuration, we'll do the firewall configuration from very scratch. Probably in the next class, we'll do that. And configuration management, how it's going to happen, licensing and software update, how it is going to happen, account administration, how it is going to happen. So this is under module 2. Moving to the next module, the security zone, will understand what is the meaning of the zone in the Palo Alto firewalls, what is the layer 2 interface, layer 3 interface, virtual wire, tap mode interface, and what is the use of this special interface, tap mode and the virtual wire.
what is the sub interface, how it can be configured. These all the practicals along with the theoretical we're going to understand. Likewise, everything here, DSCP virtual routers. What is the use of this virtual router, DSCP, how it is going to be configured in the Palo Alto firewalls. So these all practically, theoretically will understand. Then we'll move to the security NAT policy. In this security policy, we'll understand about the security policy configuration, policy administration. NAT, we'll understand the source NAT, destination NAT, U-turn NAT, and dual NAT. So 4 type NAT we are going to understand with the live practicals. Okay. So then after we'll move to the next application ID. We'll understand what is the app ID, how the based on the apps we can allow the app, block the apps, and what is the application group, application filtering, and how we can use them in the policy, how we can create the application group, how we can create the custom application as well. If the application is not applicable in the Applipedia or the Palo Alto application database, how I can create my company custom application in their database, and how we can apply in the group and filter as well. Okay. Then finally we'll land with the content ID, where we'll understand the antivirus, anti-spyware, vulnerability, URL filtering, data protections, DOS protections, right? These all the live labs probably you'll find in this lab also. We already have done the configuration. I already have tested everything. So let me show you. Probably you'll find this all inside the policy. Let me show you. See here. So you can see these are profiles or calls here. So here, if you go here and go in the action, so these are see file blocking, wildfire, antivirus, anti-spyware also might will see the policy. See anti-spyware policy, URL filtering will find also social media blocks. So we all tested here. Data filtering also we configured. See, and vulnerability protect. So everything we just did the configuration in the previous batch, wildfire, and everything we tested already tested, because some are removed, but we tested everything and we configure everything in my particular this particular firewall. So if you go here and objects, it will go see these all policy might be available here. So see this all we created. So antivirus profile, anti-spyware profile also will get that. Similar, everything we configure. URL filtering also will get here. So we having everything available, and we'll understand the these all particular content ID. It's very interesting. File blocking, how it can be do, how the zero day attack is going to happen, how the based on the zero day attack, how can we protect our network from any new signature, any new malware, any new ransomware attack, how it is going to be integrated with the Palo Alto firewall, with the wildfire server sandbox of the Palo Alto, how the public and private concept is going to come in a picture. Okay, so this all we are going to understand. Then SSL decryptions. This is very important. If your traffic is just going via the like HTTP, that's work on the port 80. That can be by default inspected by the Palo Alto firewall. Any malicious content, any data leaking is going to be happen. This is going to be inspected by the Palo Alto firewall. But if your traffic is going on the HTTPS, which is the 443, this is the already encrypted traffic. Inside of the encrypted traffic, if any malware is going to happen, any kind of the data leak is going to happen, then how firewall is going to be protect those kind of the encrypted data or traffic or malicious content. So for that, we have to understand the like the SSL decryptions, and by using this SSL decryption, we can easily protect our networks, right? So this is about the SSL decryptions. Now moving next, we having the user ID. So in our lab, you can see we having the real AD server also integrated here. Let me show you. We integrated our AD servers. For the user ID, you having the FTP server, we having the Kali Linux machine for the live DOS attack, for the live vulnerability attack. So for DOS attack, vulnerability attack, we can do all attack live from this Kali Linux machine, and we can see the live impact, how it is going to happen on the Palo Alto firewall, and how they are going to take action on it, and how they are going to block the threat or attacks which is coming from the real-time scenario. Right? So these all we are going to understand in particular content ID, all blocking, and then an user ID, we having the AD integrated. We are based on the username and their ID, we can allow some application, some destination, some kind of the communication. And then we'll move to the site-to-site VPN, where we'll understand the IPsec VPNs, how the IPsec VPN is going to be configured, theory about the phase 1, phase 2,
tunnel mode, transport mode, will understand about the IK version 1, IK version 2, will understand about the ICKM. I will understand about the how the traffic is going in the phase 1, phase 2, testing, configuration. That is side-to-side VPN. Again, we'll configure the global protect as well. And entire global protect testing will do how the remote site users can communicate your data center servers, how they are going to build the tunnels from their machine to the Palo Alto firewalls, and based on tunnel, how you can communicate with the internal server. So also we having a labs. Let me stop it here because please mute guys, please mute. Madan, Raj, let me mute. So also we having the global protect. So where it is? Second one. Yeah, thank you. So this also we are going to test. So exec in the lab and exec scenario will do that from this PC. We'll build the tunnel and based on this tunnel, we'll remotely connect this firewall by sitting in the home. This is the home user and we'll install the global protect client in this particular PC machine and we'll access the remote DC servers. So we'll get the real time flavor how the global protect is going to work, right? So something very unique, and I have all thing available resource, right? How it can be tested. So you'll get the flavor of that. Then finally, you understand the management and reporting of the dashboard. So the Palo Alto Firewall I showed earlier, you'll get the dashboard overview, basic logging, reporting, how you can pull panorama. You'll understand like every concept you are going to understand in the panorama. Some limited license problem you have, so we are not able to demonstrate each and everything in panorama. But majority of the things you'll understand what you actually need to do in the day-to-day life. So panorama, you'll get the what is the pre-rule configure, what is the post-rule configuration, how the device group configuration, how the firewall can be onboarded on the panorama, how we can create the objects there, shared rule, post rule, pre-rule, default rule, those concept, everything you're going to do. Only testing is with the pending because we don't have the license for the panorama. Okay. So if you're having any use case a special query, you want to do that in your lab, your real environment, just ask me by sharing your screen. So I'll explain that. But for me, I don't have the license firewall for the panorama, so we cannot integrate the firewalls with the panorama because panorama should be licensed to just integrating the any firewalls, and it's very costly. Okay, so this is the reason we don't have. So this is only one thing we cannot do 100% labs, but yes, we do the every concept understanding in the panorama. So what about Radius and TechX? So Radius and TechX, Radius TechX integration, again we require Radius and ICE TechX servers, which is not available. So you can I can show you how it can be integrated, but I don't have server to integrate. But there is a simple steps to do that. You just have to make the reachability with Radius and TechX, and you just have to put the Radius server details in key, then it is going to integrate. Just 1 minute configuration you have to do, and very easy to understand. Okay. So no, yeah, it's not very difficult to understand Radius and TechX integration. You just know where have to put the what values. So I'll tell that. Okay. Okay, sir. Thank you. Moving to the next, that is our active passive configuration. So in HA configuration, we having a two flavors, active passive and active active. So both configuration I'm going to cover in this particular lab. So we having the both labs available. So in both labs, we are going to understand how the active active firewall HA going to work, how the active passive is going to work. And this is just the official syllabus. But apart from this official syllabus, this is the active active and this is the active passive. Apart from this syllabus, what extra you are going to get, that is the routing. You will understand in this entire syllabus, which is not included here, you will understand how to BGP configure on the Palo Alto Firewall, BGP neighborship, right? So let me just write here, BGP configuration. You'll get OSPF configuration, you'll get static, definitely you'll get. Without the static we cannot complete. So static routing. This is just not only, we'll understand how the mutual redistribution is going to happen. BGP to OSPF redistribution or OSPF to BGP redistribution. And if you want to redistribute connected route, connected to OSPF or BGP redistribution,
we do that, right? And also static to OSPF or BGP redistribution, we do that. So this is the complete routing understanding. Also, you understand how basically on Palo Alto Firewall build the BGP neighborship, OSPF neighborship, how the route can be exchanged from the OSPF to BGP, BGP to OSPF. This is the add-on for everyone because I start covering this all in my syllabus. So it is definitely going to be covered, right? So this is all syllabus about the Palo Alto Firewall. What I just showed you, that is 100% is going to cover. None of the topic is going to be left or untouched, and everything is just going with the lab. Majority of things in lab, few are the concept. You just have to understand like single pass architecture, flow logic. These are the concept, but again, it will test in the labs. Routing comes under the virtual routers, right, sir? Yes, virtual routers. Routings come under the virtual routers. So in virtual router, you understand how routing can be done. Okay. So that's all for today's session because we just have to understand what is a firewall because it's left. So I'll continue this session in the next class because already we around 1 hour. So I don't want to stretch because initially we go in the very slow. So whenever we connect the next class, we'll understand how the firewall actually going to come in a picture and why you need the firewalls. Because we understand the security concept, we understand the syllabus, we understand the Palo Alto product, but now we need to understand why we need the firewalls and what is the principle behind using the firewalls. So we'll do that, and then we'll next class we'll discuss about how to configure the Palo Alto firewall from day 0. So step by step we'll understand each and everything. So that's all from my side for today. If anyone having any question, please feel free to ask. Okay. Good evening, sir. Good evening, Ranvi Kumar. सर ये वीकडेज में क्लास हो गया, वीकेंड में क्लास हो गया? The class will happen हम weekdays में ही करेंगे 8 से 9:30, 8 to 9:30 PM IST इवनिंग में. ओके सर. ओके. मंडे टू फ्राइडे सेशन रहेगा, बट हम 4 दिन ही करते हैं. मंडे टू थर्सडे करते हैं या कभी कभी हम फ्राइडे कर लेते हैं, बीच में छुट्टी ले लेते हैं. सो दिस इज लाइक हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. 4 डेज क्लास इन अ वीक होगा आपका मिनिमम. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सूरज, बताइए. कि एक्चुअली मुझे पूछना था सर कि डे में भी क्लास चलती है क्या, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट है, मैं नाइट में ड्यूटी करता हूँ, इसलिए. डे में तो क्लास नहीं है, बट वीकेंड का भी हमारा होता है बैच. सो वीकेंड इज ओनली ऑप्शन कि डे में होता है, तो क्योंकि डे में तो पॉसिबल नहीं है मॉर्निंग में. अच्छा, क्योंकि वीकेंड में कब होती है? वीकेंड में 10 to 12 हो जाता है, या फिर आपका इवनिंग में 4 to 6 हो जाएगा. अच्छा, तो अभी कोई सेशन स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, बट आप एक काम कर सकते हैं. यू कैन कंटिन्यू विद दिस सेशन. मैं अभिषेक सर को बोलता हूँ, ही विल हेल्प यू आउट. ओके. और कैसे कर सकते हैं उसको हम बताएंगे आपको. ठीक है सूरज? जी जी जी, श्योर सर. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन गाइज, एनीवन हैव और ऑल गुड? देखते हैं चैट में किसी ने कुछ पूछा है. यस खान जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं. Mr. Khan, can you give me the 5-minute after? Yes, Khan, I have some question. आप चैट पे पूछ लिए 1-1, या आप पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाहे तो, if you don't mind, या 1-1 ही बात करना है. So you can leave your number. I can connect after this session to you, especially. Just ping your number, so I can connect to you and we can discuss. Yes, Ranvi, हाँ बताइए. सर मुझे एक्चुअली पीसीएनसी का एग्जाम दे रहा, तो कुछ नोट्स सर वो साथ में मिल जाएंगे क्लास के, कुछ अगर एग्जाम में बात. कौन सा एग्जाम देना है, पीसीएनएससी या पीसीएनएसए? नहीं सर, एएसए दे के क्या फायदा, ई देंगे सर डायरेक्ट. मतलब हाँ, ई देना है ना. तो इसका यार देखो, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन एग्जाम का तो सिंपल एक ही रूल होता है, ठीक है, कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, सो देयर इज ओनली वे कि एग्जाम हम दे सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम का तरीका है, आजकल मार्केट में बहुत सारे सेट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जो आप मुझे वो नहीं चाहिए सर, आपसे पता. हाँ, मुझे सर डंप नहीं चाहिए. हाँ, मुझे सब नोट्स मिल जाए, फिर बाद में अगर इंप्रूव दे तो नोट्स तो कंप्लीट मिलेगा.
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो एग्जाम देना पास करना एक अलग बात होता है, ठीक है, और नॉलेज और हाँ, तो अगर नॉलेज चाहिए, इफ यू वांट टू नॉलेज नोट्स, तो दैट डेफिनेटली आई विल गिव दैट, ओके। जो आपका सिनारियो बेस्ड लैब होगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा, स्टडी मटेरियल होगा, आपकी कुछ लैब गाइड्स मिलेंगे जो कॉम्प्लेक्स है, और आपको मिलेगा कुछ, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, देयर इज एब्सोल्युटली फाइन विद अस। बट जब एग्जाम देने की बात आती है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप या तो बुक से उसको तैयारी करो, या तो फिर आपको कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करना पड़ेगा, विच आई कैन नॉट टेल ओपनली, बट यस, एग्जाम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। बट स्टडी मटेरियल एवरीथिंग, लाइक क्या क्या आपको, देखो यहाँ पे सब कुछ, जैसे मेरे पास अभी है ये पैन ओएस का बुक 10 है, जो हमारे पास ओएस वर्जन 10 है यहाँ पे। एक मिनट, नहीं ये नहीं ये जैसे पैकेट फ्लो है, ये हमारे पास बुक है, पैन ओएस 10 है, 9 है, सीएलआई कमांड्स हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कैसे पैकेट कैप्चर लेते हैं, डीबग लेते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं आपके लैब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे आपको साइड टू साइड वीपीएन बनाना है, या फिर आपको जैसे एडवांस जो लैब्स हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट के, वो कैसे बनती हैं, थ्योरी एच का क्या होता है, ग्लोबल प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, वेलडेप कैसे बनाते हैं, पैकेट फ्लो, ये सारी चीजें आपको तो मिल जाएगी नोट्स, जिसमें आप इसमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑफिशियली पीसीएनए की स्टडी गाइड है, ऑफिशियली पीसीएनए की स्टडी गाइड है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे हर क्वेश्चंस, डोमेन टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करने का सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। सो विल गेट एवरीथिंग, जिसमें आपको ये देखो मैंने इसमें, डाउनलोड किया। हाँ देखो यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लास्ट स्टेप द पैकेट प्रोसेसिंग इन द फायरवॉल। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, यही सब क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। ये पूछ रहा है कि विच इंटरफेस टाइप रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर वेयर द नेक्स्ट फॉर द वेरियस एड्रेस, तो लेयर 3 आपका हो गया। सो ये सब तो मिलेगा आपको, और इससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। Okay, so that's all. Thank you so much for everyone. Take care. We'll connect in the next session. Thanks for connecting today. See you again. Okay. Bye bye. Take care. बाय सर। Bye bye. Bye. Hey guys, just give me 1 minute. एक मिनट वेट करो आप लोग. We'll start. All right. Hello everyone. Good evening all. Right. So let me share my screen. Then we'll start. Okay. So. I hope the screen is visible, right? Everyone able to see my screen, right? Yes, sir. Okay, thank you. All right, so let's start our session, right? So as we're starting the very new session, so we'll go with the very basics, right? So we try to understand very basic fundamental of the firewalls. We try to understand like little bit concept, why the firewall come in a picture. Last time we have done little bit discussion, but today we'll try to go a little bit more inside of the firewalls. Also, I'll try to compare something related to different firewalls जो हमारे Palo Alto में है. So session will be the Hindi and English. So anyone here who not understand Hindi English both, or they are very comfortable only in the in Hindi or English, can raise your hand, okay, or just tell me. So probably I will help. I believe most of people. IM. May I know your name? IM. Who joined with the name of the IM? Can you just put your full name so I know about you? Oh, would be great if you can put your name instead of the IM. So welcome you all once again in the GuiNet technology, and we are the training company and providing the different next generation firewalls, Cisco, Versa, SD-WAN, cloud, F5, everything. So if you're having any training requirement, you can always reach out to us. Definitely we'll help out in terms of the training. Today's session more about the Palo Alto firewalls, and I'll be your instructor throughout this session. So अभी we are just starting. So initially हम बहुत slow जाते हैं, and gradually we'll go, you know, deeper and deeper. So somehow might be you guys receive the topics related to the training. Someone did some kind of the
miscommunication. The topic was Global Protect, written in there for all, marketing, but somehow that topic completed my last batch, and I communicated for the new class, but somehow they put it the Global Protect. So definitely we are going to cover the Global Protect for in upcoming session, but not today. I'm going to cover this Global Protect because we have done in the previous batch. So that is going to cover in the upcoming batch, and we'll do the deep dive. But yes, we are starting from the very zero, right? You just think आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है अबाउट द Palo Alto Firewall and you want to build your career in the Palo Alto Firewall. So वहां से हम इस बात करेंगे, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पे हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट में अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, सो यू विल ग्रो एनीवेयर. इफ यू फेलिंग इन योर बेसिक, सो यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो मेरा जो मेन फोकस होता है, पीपल शुड नो बेसिक फंडामेंटल ऑफ द फायरवॉल्स, राइट? सो टारगेट ये है कि हम बहुत स्क्रैच से, जीरो से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. एंड आई एम नॉट इन हरी थ्रू आउट द सेशन. मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है कि मुझे जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है. आई मीन लाइक मोड ऑफ द ट्रेनिंग की मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ, आपके करियर में कुछ वैल्यू एडिट कर पाऊँ, राइट? सो दिस इज माई कमिटमेंट कि थ्रू आउट द सेशन आई विल बी वेरी कोलैबोरेटिव, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? और मैं चाहता हूँ कि यू गाइज ऑल्सो बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? कि जो चीजें हैं जो मैं बताता हूँ, ट्राई टू उसको नोट डाउन करो, राइट? आप लोग उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने कलीग से डिस्कशन करो. आपका अगर इन लाइफ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, राइट, एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू वर्क ऑन द रियल सिनेरियो, रियल फायरवॉल्स, तो आप वहां पे भी जाके थोड़ा सा अपने स्किल्स को यूज करो. जब तक, एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, so जब तक अपने स्किल्स को आप यूज नहीं करोगे, यू कैन नॉट ग्रो, राइट? So you cannot grow. So this is my humble request to everyone. So we'll start from very zero. So अगर मैं जीरो की बात करता हूँ, तो फायरवॉल को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? किसी भी, यहाँ पे मैं आई कैन सी लाइक पीपल आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड. किसी को नेटवर्किंग आती है बेसिक, या किसी को नेटवर्किंग नहीं आती है बेसिक, राइट? एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू गो इधर नेटवर्किंग ऑन सिक्योरिटी. तो उसको क्या करना चाहिए? समवन इज वेरी गुड इन नेटवर्किंग, आप उसको अपने करियर में ग्रो करना है, दे वांट टू गो इन द नेक्स्ट लेवल, राइट? उसको मान के चलो कि कोई L3 पे है, L2 पे है, और कंप्लीटली ही इज इन नेटवर्किंग. सो उसको अपने स्किल्स को इनहेंस करना है, दे वांट टू ग्रो, हायर पैकेज पे जाना है, प्रमोशन लेने हैं. तो मार्केट में ना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन इसलिए है कि पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग. बहुत लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा. आप देख रहे हो कि डे बाय डे AIA आ रहा है, एंड AIA इज किलिंग लॉट ऑफ जॉब्स. बट ट्रस्ट मी, जिस फील्ड में हम लोग हैं, स्टिल AIA इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट अस, बिकॉज हमारी ऐसी जॉब है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड की, कि जैसे आपके घर में एक प्लम्बर की जॉब होती है ना, कि वो कभी बंद नहीं हो सकता है. आपके एक इलेक्ट्रिशियन की जॉब होती है, कभी बंद नहीं हो सकता. नर्सिंग स्टाफ की जॉब होती है, कभी बंद नहीं हो सकता. बैंकिंग की जॉब कभी बंद नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी फिनिश्ड. सो सिमिलरली, जो हमारा बेसिकली जो फायरवॉल है और जो हमारा नेटवर्किंग है, जिसके अंदर हम राउटर स्विचेस करते हैं, क्लाउड करते हैं, दीज आर द लाइक ऑफ वेरी सिक्योर जॉब. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उठा लो, किसी भी बैंक का उठा लो, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का उठा लो, देयर मस्ट बी IT टीम, there must be IT team, they must be owning some data center, they must having some computer, they must having some kind of the LAN cable connected there. So who is going to manage them? अगर जब तक वो IT कंपनी चल रही है, तब तक तो उसको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए ना. आज के जमाने में बिना इंटरनेट का तो कुछ हो ही नहीं सकता है. सो द इंटरनेट इज लाइक मैंडेटरी. जैसे आपके आपके अगर आपके पूरी लाइफ में से अगर आपको मोबाइल स्मार्टफोन्स को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यू विल फील लाइक आई एम डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. सो उसके बिना इट्स बिकम द लाइफ लाइन, राइट? कि जैसे आपको डेली फूड चाहिए, आपको वेजिटेबल्स चाहिए, आपको बाकी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, सेम वाइज यू नीड समथिंग that is your internet. आप बिना इंटरनेट के सर्वाइव नहीं कर सकते. whenever you wake up early in the morning, first thing you are searching, जो जनरली लोगों की प्रैक्टिस होती है, even for me also, कि where is my mobile and what messages come from the WhatsApp, emails क्या आई हैं, मैसेज क्या है, किसी ने फेसबुक कुछ भी. तो ये थोड़ा सा मतलब हमारा ऐसा लाइफ का हैबिट हो चुका है कि वी आर वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि मोबाइल और इंटरनेट के बिना हमारी दुनिया कैसी हो सकती है. वी कैन नॉट थिंक फॉर टाइम बिंग. हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ और हो, आई कैन नॉट कमिट अबाउट दैट, बट फॉर टाइम बिंग द इंटरनेट एंड द
मोबाइल्स फोन्स और स्मार्ट जो भी हमारे पास जो भी गैजेट्स हैं, दे आर बिकम द पार्ट ऑफ द लाइफ. सो इस वजह से कि जब तक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, राइट, तब तक दे नीड द आईटी इंजीनियर्स. एंड जब तक आईटी इंजीनियर की जॉब है, तब तक आपको नेटवर्क की, दैट इज सिक्योरिटी, दैट इज योर क्लाउड, दैट इज अ मैंडेटरी. सो आप इन तीनों में से किसी फील्ड में हो, ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट रिसेशन फ्री जॉब्स. तो पहली बात तो ये होगी. सो आप लोगों को टेंशन लेना है, यू आर डूइंग द राइट थिंग इन योर करियर. अगर आप जीरो भी कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट करो, तो यू आर डूइंग द राइट स्टेप. आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी लाइफ में. आप हमेशा हर रोज एक टारगेट बनाओ, every month, every day, कि I have to learn something, I have to learn something, I have to learn something. यही एक मोटिवेशन हमारे पास होना चाहिए. And the moment you have this kind of motivation, you grow like the rocket in your career. Trust me, because people are getting a lot of high salary in the market from this domain. Even you can't imagine. बस इस स्किल सेट पे अगर उनको अच्छे से Palo Alto Firewall आता है, उनको Checkpoint Firewall आता है, या Zscaler उनको आती है, that is the SD-WAN solutions आते हैं. If they know about the good in the routing switching, they know about the good about the cloud little bit. So they are like having everything in their CV, and they get shortlisted very easily from the any organization. So धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है, और जल्दीबाजी में नहीं सीखी जा सकती है. ये भी एक तपस्या है. मीन्स जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना, जैसे आप किसी भी योग करते हो, सो ग्रेजुअली आपको उसको रिजल्ट देखने को मिलते हैं. तो कुछ भी क्रैश नहीं होता है. कई लोग बोलते हैं कि जी क्रैश कोर्स कर लो हमारे से, यू विल गेट दिस, और आपको ये चाहिए. मैं बोलता हूँ कि नहीं, कभी भी कोई भी चीजें शॉर्टकट नहीं होती है. जस्ट गो इन द फुल. हमेशा टाइम लगता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. द मोमेंट यू विल गेट द नॉलेज, जब वहां से आपको नॉलेज मिलेगा ना, यू विल बी द मेक डिफरेंस. आपके जो कलीग चार साथ में होंगे, आप उनसे बिल्कुल भीड़ से अलग हो जाओगे. सो दिस इज द लाइक हाउ इट इज योर गोइंग टू हेल्प इन योर करियर. सो ये तो थोड़ा सा बेसिक आप लोग के लिए, मैं बीइंग इंस्ट्रक्टर और जो भी आप सीनियर बोल सकते हो या कलीग बोल सकते हो, दिस इज माय व्यू कि मैं जो फॉलो करता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू पास दैट. ओके, सो आई होप कि if anyone disagrees, just drop me a message or say anything after unmuting. अगर agree हो तो ठीक है, it's okay, that's absolutely fine. So now coming back to the Palo Alto Firewall, right? So I discussed, like in last class, like we just discussed about the basic fundamental about the Palo Alto, about the company, about the different vendors firewall comparison. But today we are not going to touch those things. We are going to start with the very basics. So the basic is like, when someone is going to ask you, what is the firewall and why I need the firewall, or what is the security and why I need the security, this could be the first questions. अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, so this could be your first question. So how we are going to answer these questions, right? What is the security, what is the firewall, why we need the security, why we need the firewall? So the answer is very simple. If you know the concept कि इसके पीछे लॉजिक क्या लगाने के पीछे, then you can explain in the layman language. बट अगर आपको नहीं पता है कि क्यों लगाते हैं, and you just go and Google, अगर आप ये डेफिनेशन आप सोचोगे कि मैं जस्ट सर्च करके बता दूं, तो that is not going to make now difference in your life. Why we need a firewall? I'm just searching. देखो क्या कुछ आंसर फैंसी से निकल के आएगा. So देखो यहाँ पे लिखा, what do firewall do? So firewall provide the protection against the outside cyber attack by shielding your network or network from the malicious unnecessary network traffic. So ये थोड़ा सा बड़ा ही एडवांस, ये उसके लिए सही है कि जो थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. बट अगर आप बिगनर हो एंड यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर करियर, तो आप यस हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग वालिद, सॉरी मोहम्मद वालिद, कैसे हैं आप? हाँ सर बढ़िया सर. बढ़िया. So shall we continue? क्या? हाँ, मतलब अभी just we started 8 to 9 minutes back. So अच्छा, we're just doing like basic discussion. तो कुछ क्वेश्चन है आपके? तो अभी तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो तभी मैं राइज करूंगा क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, ठीक है. So we are going very slowly and the moment you feel कि मेरे को कुछ क्वेश्चन है, आप बताना, ठीक है? We'll see. ठीक है. तो पालो आल्टो मतलब आज से स्टार्ट, आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना? हाँ, Palo Alto is like, आप ये बोलते हैं डे जीरो, इट्स लाइक बिगिनिंग ऑफ द Palo Alto. बिल्कुल जीरो डे पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सो अभी
मॉड्यूल कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो भी है Palo Alto will start from this module, बट इस मॉड्यूल से पहले हमें 2-3 क्लास करनी पड़ती है जो प्री रिक्विजिट क्लास होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है सबको अटेंड करने के लिए। मैं मैंडेटरी करता हूँ कि दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन, नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो ताकि आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, राइट? ओके सर, ओके सर। ऑलराइट, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरी जो फायरवॉल है, राइट? सो फायरवॉल की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे अगर गूगल पे आपने सर्च किया तो यू विल फाइंड द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द नो, देखो यहाँ पे कुछ आपको आंसर मिलेगा कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ फायरवॉल इज चेक द ट्रैफिक दैट इज इनकमिंग कनेक्शन मेड द प्रीडिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो अगर मैं इसको याद करने के लिए आपको बोलूं तो द डेफिनेशन इज करेक्टली फाइन। ये जो भी डेफिनेशन आपको दिख रहा है ना, ये एब्सोल्युटली 100% करेक्ट है, कोई गलत नहीं है गूगल पे जिसने भी डाला है, बट प्रोबेबली यू नॉट रिलेट इन रियल टाइम सिनारियो और रियल लाइफ सिनारियो। किसका मतलब क्या होता है? तो मैं वो पर्पस समझाना चाहता हूँ कि जब आप उस पर्पस को समझ जाओ कि व्हाई वी आर यूजिंग दैट, देन यू जस्ट गो एंड रिमेंबर दिस ऑल डेफिनेशन। अब जाकर उसको बोलो एंड गिव द रियल टाइम एग्जांपल्स, देन यू विल गेट द फुल कॉन्सेप्ट। सो ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ फायरवॉल्स की, तो फायरवॉल अगर मैं बात करता हूँ तो फायरवॉल जो कंपनी है बनाने वाली, जो इंडिया में जो मेजर फायरवॉल्स कंपनी बनाने वाली है, मैं म्यूट करता हूँ सबको, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ठीक है? सो जो हमारे यहाँ फायरवॉल बनाने वाली कुछ कंपनी है, जैसे हमारे पास, जैसे अभी हम Palo Alto की बात कर रहे हैं, तो Palo Alto फायरवॉल, Palo Alto एक वेंडर है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी एक हमारे पास चेक पॉइंट फायरवॉल है हमारे पास, ठीक है? फोर्टिनेट की फायरवॉल्स आती हैं, ठीक है? फोर्टिनेट और फोर्टिगेट एक ही चीज है, एक वेंडर, एक प्रोडक्ट आपका, एक आपका कंपनी है। एक आपके पास सिस्को की फायरवॉल आती है, ठीक है? सिस्को ASA फायरवॉल्स आते हैं आपके पास, सपोज के भी फायरवॉल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? ऐसे ही आपके एज्योर के भी फायरवॉल आते हैं, क्लाउड बेस आ जाते हैं। ऐसे ही आपके कार्टो की भी फायरवॉल आती हैं आजकल बहुत सारी कंपनियां मार्केट में। आप लिखने जाओगे तो गूगल पे सर्च करोगे तो एक्सेट्रा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, आपको 20, 30, 50 प्लस कंपनी मिल जाएंगे। सो दीज आर द कंपनी और वेंडर बोल सकते हैं कि जो फायरवॉल को बनाती हैं। तो ये फायरवॉल किस तरीके की हो सकती हैं? फर्स्ट, ये फायरवॉल आपके दो तरीके के हो सकते हैं, जितने फायरवॉल हैं ये फायरवॉल आपके बेसिकली या तो कुड बी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अब आप लोग लगेगा क्या सॉफ्टवेयर सर बता रहे हैं? दूसरा एक हार्डवेयर फायरवॉल हो सकता है, ठीक है? से सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और हार्डवेयर भी हो सकते हैं। तो अब मुझे क्या लेना है, कौन सी फायरवॉल लेनी है? तो होल्ड योर थॉट्स, मैं बताता हूँ एक एक करके सॉफ्टवेयर कहाँ यूज करना है और हार्डवेयर कहाँ यूज करना है। तो ये तो हो गई आपकी जो फायरवॉल कंपनी बनाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, राइट? हम लोग किस किस मोबाइल होते हैं? हम एप्पल के मोबाइल यूज करते हैं, हम नोकिया का यूज करते हैं, हम सैमसंग का यूज करते हैं, हम MI का यूज करते हैं, और भी माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल्स आते हैं। सो सबका पर्पस सेम होता है। मोबाइल्स के जो फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स जिसमें बात करता हूँ, मोबाइल फोन्स जिसके बात है, उनके सबका क्या काम होता है? बेसिक काम क्या होता है? कॉलिंग चाहिए आपको, कॉलिंग चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस पे आपका इंटरनेट सपोर्टेबल होना चाहिए, इंटरनेट सपोर्टेड, जिसमें आपको 3G 4G 5G जो चल रहा होगा, तो इसमें 3G 4G और 5G आजकल नया आ गया है, तो ये सारे सपोर्टेड होना चाहिए। इसके अलावा आपके जब इंटरनेट सपोर्टेड है तो ऑलमोस्ट सारे जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो सारे हो जाएंगे, व्हाट्सएप भी आपका चल जाएगा। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इसके अलावा आपको चाहिए, ये तो हो गया चलो कॉलिंग इंटरनेट, ये तो बेसिक नीड्स है। स्टोरेज आपको चाहिए एक, ठीक है? स्टोरेज के साथ आपको उस पर रैम चाहिए, ठीक है? और रैम के साथ साथ भी इसके कुछ कोर गोल्ड कोर प्रोसेसर्स होते हैं, वो आप मान के चलो कि जस्ट ये सारे छोटे छोटे चीजें होते हैं। तो ये आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो जब भी, सो आपके पास सबसे पहले दिमाग में होता है कि मेरे पास बजट कितना है, लाइक मेरे पास कितने पैसे हैं। तो हो सकता है कि आपके पास 50,000 INR में बात कर रहे हैं, तो 50,000 हैं आपके पास। सो 50 INR में विच ऑलमोस्ट इक्वल टू आपके 65 USD, राइट? और लेट्स जस्ट टेक 70 US डॉलर, ये हो सकता है। दो ही कंडीशन हो सकते हैं आपके।
सो आपके पास एक बजट है, यू नो कि मेरे बजट इतना ही है एंड आई कैन नॉट स्ट्रेच माय बजट। आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले अपना पैसा चेक करते हो, राइट? ऐसा नहीं कि आप बिना पैसे के जाकर आप कुछ भी खरीद लोगे। तो सबसे पहले आपके बजट होता है कि यार मैं क्या, मेरे पास बजट है। सो यू फाइंड कि मेरे पास बजट इज 50,000 which is equivalent to $70, राइट? जस्ट अप्रोक्स आई एम जस्ट टेलिंग। तो इस बजट में मेरे को क्या फोन मिल सकता है? क्या मैं एप्पल का आईफोन खरीद सकता हूँ? क्या मैं आईफोन ले सकता हूँ? या आईफोन नहीं ले सकता हूं मैं, मेरे को सैमसंग का फोन लेना पड़ेगा, राइट? सो सैमसंग का, या मैं नोकिया का, या मैं एमआई का, जो भी एक्सेट्रा आप यहाँ पे जोड़ लो नाम। तो अब यहाँ पे आपको बात आती है कि चलो ठीक है, अगर सबसे लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दैट इज द आईफोन या सैमसंग, जो भी जो हॉट सेलिंग मार्केट है, या वन प्लस का है, ये सारे जो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप 50,000 में आईफोन खरीद सको, तो यू हैविंग अ एम्पल ऑफ चॉइस कि अब मैं आपके पास ये 4 फोन्स हैं या 3 फोन्स हैं, अब ये फोन आपको 50K का पड़ रहा है, और ये फोन आपको 40K का पड़ रहा है, और ये फोन आपका 30K का पड़ रहा है, राइट? बट यू आर फाइंडिंग कि ये जो फोन है, इसके अंदर स्टोरेज जो है 256 GB का है, राइट? इस फोन के अंदर 128 GB का है, और इसके अंदर भी मान के चलो इसके अंदर भी 128 GB का हमारा स्टोरेज है, या रैम भी बोल सकते हैं, जो भी है, जस्ट टेक एनी रेफरेंस नंबर। बट प्राइसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे को। तो नाउ अब आपके पास आता है कि ब्रांड किसकी अच्छी है, ब्रांड किसका अच्छा, तो यू विल गो विद यार सैमसंग, एमआई से बहुत अच्छा ब्रांड है, नोकिया से भी अच्छा ब्रांड है, एंड देन यू विल सी कि किसका सपोर्ट कैसा है, फीडबैक कैसा है उस मोबाइल का। तो आप बहुत सारी चीजें रिसर्च करते हो, आप जीएनसी मरीना पे जाते हो, आप कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद देखते हो यार कि मेरे सिटी में इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं, मेरा मोबाइल खराब होगा तो मेरे घर के पास इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, एंड देन यू डिसाइड कि विच मोबाइल शैल आई बाई। तब कितना रिसर्च करते हो, राइट? सबका काम ऑलमोस्ट सेम है, सारे फोन किसी से खरीद लो, कोई भी फोन खरीद लो, सबके पास आपको, मतलब कैमरा भी एक मैं लिखना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैमरा होता है यहाँ पे, कैमरा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपका सारा काम हो जाएगा। बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू बाई, आप अपनी जेब देखोगे, एंड जेब के बाद जो पैसे आपके पास, एंड देन यू डिसाइड कि विच वन इज गुड फॉर मी। सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द Palo Alto फायरवॉल या जो चेक पॉइंट फायरवॉल, इनके पास भी जब आपको खरीदना होता है, चाहे सॉफ्टवेयर खरीदो या हार्डवेयर खरीदो, तो आपके पास, आपकी कंपनी के पास देयर इज अ बजट। सो आपके पास जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे डिफाइन अ बजट कि मेरी कितनी बजट है, और मेरे को ना अपना सिक्योरिटी सॉल्यूशन लॉन्च करना है। तो हर कोई प्लान, जो भी कोई प्लान करने वाला होता है, द प्लान मोमेंट वी स्टार्ट इट इज स्टार्ट विद द बजट, कि हमारा बजट क्या है और किस हिसाब से हम बेसिकली इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपने कंपनी के नेटवर्क के अंदर, राइट? सो वो बजट आपके सबसे पहले, अगर आपको बजट ही नहीं है, यू आर लाइक विजनलेस, यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपका, जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली है, जब बाय करने के आप बोलते हो यार पैसा का शॉर्टेज हो गया, तो पूरा बेकार हो गया ना, सब कुछ एफर्ट आपका बेकार हो गया, कि आपने वेंडर बुला लिया, यू स्टार्ट डूइंग द लाइक लॉट ऑफ थिंग, और आपका वहां पे आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास आई डोंट हैव मनी। सो बजट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन यू गो विद द वेंडर्स। आप Palo Alto से कांटेक्ट करते हो, हाँ जी बताओ तुम्हारे बॉक्स के अंदर क्या फीचर है, यू गो विद द चेक पॉइंट एंड टेल व्हाट इज योर फीचर, यू गो विद द Fortinet and tell what is your feature, Cisco ASA के पास जाते हो, एंड देन एवरी वेंडर कम टू योर कंपनी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब आपके पास, जो इनके सेल्स टीम के, जो प्री सेल्स के बंदे होते हैं, टेक्निकल टीम के बंदे होते हैं, दे कम टू यू एंड दे विल डेमोस्ट्रेट द फंक्शनलिटी ऑफ दिस डिवाइसेस, कि बॉस आप अगर मेरी फायरवॉल लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा चेक पॉइंट फायरवॉल के इन कंपेयर, वो कंपेयर करके भी दिखाएंगे आपको, एंड हाउ वी आर सपोर्टिंग, हम आपको किस तरह की कस्टमर सर्विस देंगे, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीज बताते हैं। ये तो एक बात हो गई, जस्ट एक शॉर्ट स्टोरी, कि मतलब वेंडर्स कैसे हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है फॉर द Palo Alto फायरवॉल जो करते हैं। अब ये फायरवॉल आपका एक सॉफ्टवेयर भी हो सकती है और एक हार्डवेयर भी हो सकती है। जब मैं बात करता हूँ हार्डवेयर का, हार्डवेयर जैसे क्या होता है, जैसे आप सिस्को का राउटर, आप लोगों ने आई थिंक सबने सुना होगा सिस्को राउटर का, सिस्को के स्विच के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। सो दीज सिस्को राउटर्स एंड स्विचेस, इट कुड बी आल्सो सॉफ्टवेयर बेस्ड नाउअडेज, और बहुत पहले से आ रहे हैं, एंड कुड बी द हार्डवेयर बेस्ड। तो अगर आपने फिजिकली कहीं देखा होगा तो देखो ऐसा कुछ दिखता है, जैसे आप गूगल पे जाते हो एंड यू जस्ट ट्राई टू सर्च इट, सिस्को राउटर्स। सो देखो ये जो डिवाइस है ना, दीज आर द हार्डवेयर डिवाइस,
कि फिजिकल डिवाइस होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, दीज आर द फिजिकल डिवाइस जिसपे आप जाकर अपने इसको पावर सप्लाई करते हो, राइट, इसको पावर देते हो। इसके अंदर लैन केबल जो कैट 5 केबल एंड कैट 6 केबल्स होते हैं, यू कनेक्ट दोज केबल्स ऑन इट, एंड आफ्टर कनेक्टिंग दीज केबल्स एंड ऑल, पावर सप्लाई देने के बाद लैन वैन कनेक्ट कर दो, तो इन सर्विस आ जाता है, एंड यू स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन जो भी आप करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग दोज ऑल थिंग्स। तो दिस इज द लाइक फिजिकल डिवाइस। सिमिलर वे में हमारे पास जो फायरवॉल्स होती हैं वो भी हमारे पास, दे कुड बी द फिजिकल एंड दे कुड बी द सॉफ्टवेयर। तो फिजिकल इज द हार्डवेयर, मतलब आपको फिजिकल डिवाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके के फायरवॉल दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पालो अल्टो फायरवॉल अगर देखते हो, मैं पूरा डिटेल में इसको एक दिन समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या है इसको, क्या क्या। देखो ये जैसे एक छोटा सा फायरवॉल है, चल सी कि ये एक पालो अल्टो की फायरवॉल है जो फिजिकल फायरवॉल जिसको मैं हार्डवेयर बोलता हूँ। इस फायरवॉल के अंदर यू विल सी दैट PA220 जो हार्डवेयर सीरीज है, इसके बैक साइड में आपको पावर सप्लाई मिलेगा, इसके आगे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं। एक एक पोर्ट्स में फंक्शनलिटी अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा आप लोगों को। कंसोल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, कुछ यहाँ पे स्टेट्स के पोर्ट्स हैं जैसे HA का, स्टेट्स का, अलार्म का, टेम्परेचर का, पावर के यहाँ पे फैन लगे हुए हैं। सो दिस इज द फायरवॉल, आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस तरह की फिजिकल फायरवॉल होती है। तो फिजिकल इज जस्ट समथिंग कि आप इसको समझो कि दिस इज द हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल एंड दिस कैन बी इंस्टॉल इन योर कंपनी लोकेशन, डेटा सेंटर लोकेशन, और इसको आप पावर सप्लाई सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बट व्हाट इज द सॉफ्टवेयर फायरवॉल? सो देखो सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज अवेलेबल एवरीवेयर, एंड यही नहीं सिर्फ वेंडर हैं जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फायरवॉल बनाती हैं। आपका जो कंप्यूटर जो है ना, जिसको आप यूज करते हो, इसके अंदर भी फायरवॉल है। देखो ये रहा आपका फायरवॉल, आप लोगों ने कभी यूज नहीं किया होगा, लेकिन इसको डिफेंडर, विंडो डिफेंडर फायरवॉल बोलते हैं। ये विंडो का फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल विंडो का, ठीक है। अब इस फायरवॉल के अंदर भी वो आप सारी चीजें कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ इस पीसी के अंदर कुछ एप्लीकेशन को बंद कर देना, तो मैं बंद कर सकता हूँ। उसको चाहूँ इसको अलाउ करना, तो मैं इसको अलाउ भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को। इसमें भी आपको बहुत सारे एक सेकेंड, सिक्योरिटी पैनल से खुल जाएगा। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। Let me see. हाँ हाँ सर, एक्सक्यूज में, क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए। हेलो, क्या Yes. आपने बताया कि विंडो में भी फायरवॉल होता है, तो इसी तरफ से लिनक्स में भी होगा, जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन पे इनबिल्ट कुछ डिफेंडर्स, उसको फायरवॉल, डिफेंडर फायरवॉल बोलते हैं, जो आप तो उसको यूज करके आप डिफेंडर फायरवॉल सब में यूज होता है, लिनक्स में भी, विंडो में भी, या अदरवाइज और कोई भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो आप अगर लिनक्स में बात करोगे तो हेलो। फायरवॉल। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी मेरे पास? हाँ सर, हाँ बोलिए सर। आ रहा है ना आपके पास? जी सर। हाँ लिनक्स ओएस फायरवॉल की जो बात करते हो आप, तो इसके अंदर भी फायरवॉल होता है, राइट। सो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये जितने भी ओएस हम बनाते हैं, चाहे मैक ओएस हो, चाहे आपका बेसिक जो सिक्योरिटी चाहिए ना आपको, बेसिक सिक्योरिटी इज मैंडेटरी फॉर द एवरी डिवाइसेस। आप अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, इंटरनेट से आप यूज कर रहे हो, राइट, एंटीवायरस नहीं डालोगे, एक होता है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं। सो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इज वेरी मैंडेटरी फॉर द एवरी डिवाइस, चाहे आपका कोई डिवाइस, आपका जो मोबाइल फोन होता है उसके अंदर भी यू नीड सम काइंड ऑफ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज। सो endpoint devices also need some kind of the security protections. So आप उसके अंदर आपको यूज करना पड़ता है। OS is like very intelligent, या तो आपके डिवाइस में एडिशनल सप्लीमेंट या सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, या you need to just rely on your OS। तो कुछ OS ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एंड्रॉयड के OS की, लिनक्स के OS के, दे आर वेरी रिलायबल। सो उनके OS के अंदर एक खासियत होती है कि वो बेसिकली उस तरह के जो कंटेंट होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनको एंटरटेन ही नहीं करते हैं, उनको अपने अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ही इस तरह से किया जाता है कि आपको एडिशनल, आपको कोई सप्लीमेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विंडो काफी थोड़ा सा वल्नरेबल है, क्योंकि इसके अंदर आपको एंड पॉइंट के अंदर इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है, तो देयर इज अ हाई चांस कि इस पे आपका बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं in terms of the malicious attack वगैरह। तो they are always allowed to use the defender firewalls, but हम इसको यूज नहीं करते बाय डिफॉल्ट। सब कुछ आपका अलाउ ही होता है इसके अंदर, डिफेंडर फायरवॉल के अंदर देखोगे सब कुछ अलाउ होता है। सो दीज आर द बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स जहां पे आप इसको यूज करते हो, राइट।
हाँ जी प्रीतम, एंटीवायरस को भी हम एंड पॉइंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंटीवायरस इज द एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डीएलपी इज द एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ये सारे एंड पॉइंट सिक्योरिटी के ही पार्ट। सो एंटीवायरस इज मस्ट एंड इट इज नोन एज द एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ये चाहिए। था। हेलो यस सौरभ, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। सर, ये पूछ रहा था कि फायरवॉल को कहाँ यूज करना बेस्ट रहता है सर? सो आई वुड अगेन लाइक टू अंडरस्टैंड, जब फायरवॉल की बात कर रहे हो तो मैं ये समझू कि आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करें, इंटरप्राइज में बात करें, राइट? यस। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ, ठीक है? विल गेट द आंसर, ठीक है? सो अब हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड अ फायरवॉल। हमने समझ लिया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स हो गई जो हम विंडो में यूज करते हैं। इसी तरीके से जितने वेंडर्स मैंने गिनाया अभी आप लोगों को बताया, दीज वेंडर आल्सो यूज द सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये फायरवॉल है, जो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, तो इनका क्या लॉजिक होता है, कैसे यूज होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। बट वी कैन अंडरस्टैंड फॉर टाइम बिंग कि जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं। बट इसका डिप्लॉयमेंट का तरीका क्या होगा, आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन इट। अब हम बात करते हैं व्हाई वी नीड अ फायरवॉल्स एंड वेयर वी कैन प्लेस द फायरवॉल्स, व्हाट इज द राइट प्लेस। सो इसको समझने से पहले मान के चलो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप क्या, 2 तरह की सिक्योरिटी होती है। एक हमारे पास होता है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होता है लॉजिकल सिक्योरिटी, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को। बट आई वुड लाइक टू अगेन रिपीट दोज थिंग्स, सो कई लोग नए हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड। जस्ट आप लोग मुझे 1 सेकंड दो। सो मैंने बताया था यहाँ पे कि हमारे पास एक फिजिकल सिक्योरिटी होती है और एक हमारे पास लॉजिकल सिक्योरिटी होती है। लेट मी जस्ट यूज, क्यों नहीं हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है? Why it's not working? Okay, just give me 1 minute. Let me, somehow this pen stop working. Let me kill this task. Okay. सर एज में 34 पेज ओपन है, उसको क्लोज कर लो। एक मिनट। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, देखता हूँ अभी चला कि नहीं। हाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास 2 टर्म होते हैं, दैट इज फिजिकल सिक्योरिटी एंड लॉजिकल सिक्योरिटी। So just understand this. So when I talk about the physical security, so there is an example कि मान के चलो कि ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, this is your building. इस बिल्डिंग के again the same examples कि there is be the one gate for your this gate is like कि आपका physical entry gate है, physical entry gate, and यहाँ पे आपका एक मान के चलो कि ये गेट हो सकता है जिसको आप राउटर बोलते हो, and this is going to be connected with इंटरनेट वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है एंड इन मिडिल ऑफ दिस आपके पीछे क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विच है, इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। सो देखो देयर इज 2 गेट, ये एक लॉजिकल गेट है आपका और एक फिजिकल एग्जिट एंट्री गेट है। तो फिजिकल गेट पे आप क्या करते हो, फिजिकल गेट मींस कि आप ऑफिस जाते हो एंड एनीवन कमिंग इनसाइड द ऑफिस, चाहे किसी तरह का स्टाफ हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, एनीवन इज कमिंग टू द ऑफिस, दे फर्स्ट हैव टू शो देयर आइडेंटिटी। क्या करता है, इन होने से पहले, इसके अंदर जाने से पहले दे हैव टू शो देयर आइडेंटिटी, राइट। या वो आइडेंटिटी कई तरीके से शो कर सकते हैं, या तो वहां पे कोई गार्ड है उसको शो आईडी कार्ड कर दे, राइट, या फिर वहां पे पंचिंग मशीन हो सकती है, दैट कैन बी पंच्ड, राइट। सो वो कंपनी के अंदर जाएगा, नहीं तो गेट नहीं खुलेगा और गार्ड इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट, यू आर अलाउड टू गो इनसाइड, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो,
राइट, या फिर आपको कुछ ना कुछ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यू आर अलाउड। एक तो हो गया ये। दूसरी बात, इफ यू आर गोइंग आउट ऑल्सो, तो आउट आते वक्त भी यू नीड टू डू योर पंच, आईडी कार्ड आपको पंच करना पड़ता है कि व्हाट इज योर एग्जिट टाइम। आपको कई बार थम्स भी पंच करने पड़ते हैं कि व्हाट इज योर एग्जिट टाइम। सो आप इन भी जाते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ एक्शन देना पड़ता है, एंड आउट भी जाते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ एक्शन देना पड़ता है, एंड समवन इज वाचिंग टू यू। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रीली आप जा रहे हो आ रहे हो। So, ये फिजिकल सिक्योरिटी जो हर जगह होता है, आप किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप मेट्रो स्टेशन चले जाओ, यू विल गेट सच काइंड ऑफ द सिनारियो। तो ये तो हो गई आपको चेक करने के लिए जो फिजिकली है। बट अब मुझे बताओ कि देयर इज ए पर्सन, ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपके कंपनी के इनसाइड जो भी इंफ्रा है या अनऑथराइज जो एक्सेस जो करना चाहते हैं, दे कैन नॉट डू, और कंपनी की कोई वैल्यूएबल चीज दे कैन नॉट गेट आउट फ्रॉम योर फिजिकल गेट। तो उसको बचाने के लिए आप सिक्योरिटी लगाते हो, क्योंकि आप अगर ये नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आपके कंपनी के अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ, लैपटॉप रखा हुआ लिया और लेके बाहर चला गया। सो हु इज गोइंग टू वॉच देम? नोबडी इज गोइंग टू वॉच। तो आपके एक सामान एसेट चोरी हो गया ना। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट? सो ये एक चीज तो हो गई आपको फिजिकल सिक्योरिटी करने के लिए। अब बात करते हैं लॉजिकल। यहाँ पे एक स्विच है, दिस इज स्विच, और इसके पीछे एक यूजर बैठा हुआ कंप्यूटर लगा के, दिस इज कंप्यूटर ऑफ द यूजर, ठीक है। ये यूजर बैठा हुआ है। अब ये यूजर क्या कर रहा है कि ही इज टॉकिंग टू द इंटरनेट, ये इंटरनेट से बात कर रहा है कंटिन्यूअस। सो ये ऐसे ऐसे जा रहा है और इंटरनेट से बात कर रहा है। अब while talking to the internet, might be he download some file, इंटेंशनली कर सकता है या अनइंटेंशनली कर सकता है। कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड किया और उस फाइल में हो सकता है कि कोई वायरस हो, या राइट, कोई वायरस हो। तो वो फाइल जैसे ही डाउनलोड हुई, वो आपका फाइल यहाँ से नेटवर्क में आया, इसको भी इफेक्ट करेगा, यहाँ से आपके लैन में आया, इसको भी कुछ वॉर्म प्रोपगेट करेगा और इस पीसी को इफेक्ट करेगा। जैसे ये पीसी वायरस से इफेक्ट हुई, ये नेटवर्क में कनेक्टेड है, कोई दूसरा भी कनेक्ट होगा उसको भी ये पीसी इफेक्ट कर देगा, कोई तीसरा भी कनेक्टेड उसको भी कर देगा, चौथा भी। वॉर्म प्रोपगेशन इसको बोलते हैं, वायरस वॉर्म प्रोपगेशन। सो दिस इज गोइंग टू इन्फेक्ट इंटायर योर कंपनी नेटवर्क सिस्टम्स। सो एक तो प्रॉब्लम हो गई ना, तो हाउ वी आर गोइंग टू सिक्योर? दूसरा सिनेरियो यूज केस क्या हो सकता है कि दिस पीसी, ये वाला जो यूजर है, इसका इतना सा भी मन नहीं भरा कि ये क्या क्या कि आपकी कंपनी किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, माइट बी दे आर डीलिंग विद द वेरी मेजर प्रोजेक्शन फॉर द गेट डील डन विद द, माइट बी 1000 करोड़ की कोई डील होने वाली है, राइट। और आपको पता है कि आप क्या उसको बिड को कोट करने वाले हो, जो भी बिड है उसकी पीपीटी आपके कंपनी को, ये जो कलीग है इसके पास पड़ा हुआ है, जो प्री सेल्स का बंदा है उसके पास। उसने क्या किया कि इस डेटा को जो अपने लैपटॉप में, कंपनी के लैपटॉप में, हो सकता है कंपनी के लैपटॉप ना डेस्कटॉप हो जो ऑफिस में रखा हो, तो उसके हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है। इसने क्या कि उस डेटा को अपने जीमेल में भेज लिया, और जीमेल में भेजने के बाद या व्हाट्सएप अपलोड करके, फेसबुक से अटैच करके, कुछ भी करके, और वो किसी दूसरे कंपनी के बंदे को बता दिया जो भी उसके कॉम्पिटिटर हैं कि देखो बॉस, हमारी तो ये स्ट्रेटजी है, और आप देख लो अगर इससे आप लोअर बीट लगाते हो या इससे बेटर स्ट्रेटजी आप बनाते हो तो दो ही कंप्यूटर हैं, यू कैन विन दैट डील। तो अगर ये बंदा को पता चल रहा है हमारी स्ट्रेटजी, तो हमारा वो ऑलरेडी वीकनेस जानता है, एंड देन ही कैन प्लान कि कैसे मुझे इसको, मतलब बीट को जीतना है एंड कैसे इनको लूज करवाना है, राइट। सो ही विल गो एंड फाइट अगेंस्ट यू, और वो आपसे अट्रैक्टिव ऑप्शन देगा क्लाइंट को, एंड क्लाइंट विल डेफिनेटली पास ऑल लाइक कॉन्ट्रैक्ट टू दिस पर्सन। तो जब अगर ऐसा होता है तो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू लॉस्ट योर कंपनी डेटा, जो कि कोई सिक्योरिटी यहाँ पर गार्ड तो चेक नहीं कर सकता है, तो इंटरनेट से गया। सो हाउ गार्ड इज गोइंग टू चेक दैट? दिस इज नॉट एब्सोल्युटली पॉसिबल कि गार्ड आपका जाके चेक कर सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस अगेन यू आर लूजिंग योर बिजनेस, एंड माइट भी ये वाला बंदा जो है, इसको कुछ इस कंपनी ने पैसे दे दिए हो कि लो भाई तुम भी खुश रहो, तो ऐसे तो भाई कंपनी आपकी बिक जाएगी, फिर तो बंद हो जाएगी ना। You cannot survive for longer period of time, right? Sustainable नहीं है ये। So why and where we use the firewall and how we can protect these kind of the activities? So इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हमें यहाँ पे लॉजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे लगाया था हमने, तो फिजिकल सिक्योरिटी तो हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक मिनट, ब्लॉक कैसे बंद हो गया मेरा,
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो लॉजिकल सिक्योरिटी है कैसे प्लेस होगा। सो टू प्रोटेक्ट योर लॉजिकल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेट के थ्रू कुछ भी ना ही आपका डेटा लीक हो, ना कोई वायरस हो, ना कोई वॉर्म प्रोपगेशन हो, ना कोई मलिशियस एक्टिविटी हो, ना कोई अटैक हो, ना कोई आपका फाइल लीक हो, किसी तरह का जीरो डाटा भी ना हो। सो यू रिक्वायर्ड सम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। पहले तो हम फायरवॉल बोलते थे, लेकिन अब उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो आपको इसके बीच में कुछ ना कुछ, या तो इस राउटर को रिप्लेस करके फायरवॉल लगा दो, या इन राउटर और स्विच के बीच में एक डिवाइस लगाओ जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। सो माइट बी, लेट मी जस्ट यूज सम डिफरेंट कलर। सो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूँ, चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिवाइस बनेगा यहाँ पे, जो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द माई फायरवॉल। तो ये फायरवॉल जो हमारा है ना, एक तरीके से जो यहाँ का गेट का काम कर रहा था ना, यहाँ पे ये जो गेट का इन आउट का काम कर रहा था, ऐसे ही जैसे ही आपका पैकेट यहाँ पे आएगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल जब इसको आउट भेजेगा तो भी चेक करेगा, और जब इस पे आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो भी चेक करेगा, मतलब इन भी आओगे तो भी चेक करेगा। तो इन शॉर्ट, कि किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन आप करते हो, जैसे यहाँ पे आप कर रहे हो, बहुत रियल टाइम एग्जांपल्स है, आई बिलीव आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, दिस इज माय इंटेंशन। तो यहाँ पे आप लोग जो भी एंट्री एग्जिट कर रहे हो, समवन इज वॉचिंग टू यू एंड ही इज मेकिंग श्योर कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करो जिससे मेरी कंपनी का नुकसान हो। दिस इज मेन इंटेंशन। यहाँ भी आपको सेम चीज समवन इज डूइंग, कि आपके एक एक कम्युनिकेशन को, ये यूजर क्या इंटरनेट से बात कर रहा है। आप लोग को लगता है कि हमें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट में कंपनी आजकल आपके, आप अगर ब्राउजर में कोई सर्च भी करते हो ना, ब्राउजर के अंदर, उसको भी अगर कंपनी अगर ट्रैक करना चाहे, इट इज 100%, एक एक स्क्रीनशॉट तक बन जाते हैं कि आपने पूरे दिन में क्या किए हैं, और रिकॉर्ड रहते हैं। अगर कंपनी ने आपने उस तरह के सोल्यूशन ले रखी है, तो जो जनरली आजकल कंपनियां जो जा रही हैं जिस सोल्यूशन पे, तो आपकी पूरे 9 के 9 घंटे आप क्या ऑफिस में करते हो, किसको मेल किया, क्या आपके ब्राउजर पे गूगल पे सर्च किया, दे ऑल गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, और वो स्टोर रहता है, जब चाहे तो रिट्रीव कर सकती है, देन इट इज गोइंग टू बी आउट, और जो भी कुछ बाहर से अंदर की तरफ आ रहा, उसको भी इंस्पेक्ट कर रहा है इन एंड आउट के केस में। सो फायरवॉल इज समथिंग विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर इंटरनल नेटवर्क सिस्टम्स, इंटरनल डेटाबेस, इंटरनल फाइल, जो भी रिपोजिटरी है, इंटरनल सर्वर्स हैं, अगर किसी भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर प्रोटेक्ट करना है, सो टू प्रोटेक्ट एनी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। बस अभी वो आया कनेक्ट कर रहा हूँ तो सर ने वो बता दिया था। अच्छा, अभी अभी लेट ज्वाइन किया क्या आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, बिना की कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें यहाँ लिखता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, इस पे कलर सही नहीं बैठ रहा, सो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। द फायरवॉल हेल्प टू प्रोटेक्ट योर की जगह आवर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मैं सिक्योरिटी क्यों लिखा, आप समझो इसको बात को। तो ऐसा नहीं है कि फायरवॉल आपका सिर्फ नेटवर्क की डिवाइस को, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे सिस्को, सिस्को क्यों लिख, किसी तरह का भी राउटर हो सकता है, राउटर्स, आपके स्विचेस, ठीक है। इस घर के अंदर यही सारी चीजें लगी होंगी, पीसीज, राइट, लैपटॉप, आपके सीसीटीवी, राइट, आपके आईपी फोन्स, राइट, आपके जो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस होती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, राइट, सो शॉर्ट में इसको लेते हैं। फिर और क्या हो सकता है इसके अलावा आपके पास, आपके इसके अलावा जो हो सकता है, एक सेकेंड, कहाँ गया, एक्सेस पॉइंट। हाँ मैं वही लिख रहा हूँ अभी, फायरवॉल का वीक पॉइंट क्या है? मैं बता रहा हूँ, एक्सेस पॉइंट, आपके पास प्रिंटर्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, फायरवॉल भी हो सकती है खुद, राइट, सो WLC हो सकती है, तो दुनिया भर के डिवाइसेस हैं। तो अगर इनको आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट, आपके जो भी सर्वर के अंदर डेटाबेस होते हैं उनको, सो यू नीड अ फायरवॉल्स। सो फायरवॉल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब ये डेफिनेशन जब पढ़ोगे आप,
तो आपको समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा था कि जब ये फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटसाइड साइबर। मैं बताया कि बाहर से कोई साइबर अटैक कर, मतलब किसी तरह का कोई बंदा अटैक करना चाहता है आपके नेटवर्क पे, तो एक तरह से सील्ड बन के रहता है। सील्ड मतलब फायरवॉल का मतलब क्या होता है? फायरवॉल का अगर मीनिंग जाकर सर्च करो गूगल पे तो फायर वॉल मतलब एक इसको धधकती हुई एक दीवार बोल सकते हैं आग की। सो उसमें अगर आप बिना प्रोटेक्शन के जाओगे तो यू विल लाइक पूरी तरीके से आप जल जाओगे उसके अंदर। आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कुछ जो उस फायर से प्रोटेक्ट कर सके। अगर बिना प्रोटेक्शन के गए तो यू विल बी डाई। सो दिस इज लाइक समथिंग कि एक जलती हुई आग की दीवार है, अगर आप उसमें बिना प्रोटेक्शन के जाओगे तो दैट इज गोइंग टू किल यू। सो दिस इज अ फायरवॉल। सो किसी भी तरीके का आपका अगर बाहर से कोई प्रोटेक्शन आ रहा है एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट देम, तो आपको एक सील्ड बनाना पड़ता है कि जिससे आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो भी आपके डिवाइसेस हैं, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मलिशियस अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक। मलिशियस ट्रैफिक क्या होते हैं? कोई जैसे आपने रैंसमवेयर अटैक सुना होगा, साइबर अटैक आपने सुना है, आपने किसी तरह का वायरस का अटैक होता है आपका, तो अगर इन सबसे किस तरह का आप कंपनी का डेटा लीक प्रोटेक्ट करना है, तो इन सब चीजों से आप अगर प्रोटेक्शन चाहिए, सो यू नीड अ फायरवॉल। यूनिट फायरवॉल। आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी कि फायरवॉल की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, ये मेरा कंप्यूटर है, अगर दिस कंप्यूटर वांट टू टॉक टू द इंटरनेट, सो इसको इस जलती हुई आग की दीवार से क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्रॉस तभी करेगा जब इसके कनेक्शन को यहाँ पे अलाउ करने के लिए आपके पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या पॉलिसी होना चाहिए। ACL, इसी को हम एडवांस वर्जन में बोलते हैं पॉलिसी। इफ दिस available in this particular firewall कि hey PC you are allowed to go out, then only he go out, else it will be denied। means denied का मतलब होता है कि he will be dead, the packet will be dead at the firewall only। और अगर डिनाइड नहीं है तो ये अलाउ होगा एंड देन इट इज गोइंग टू इंटरनेट। फिर जो पैकेट यहाँ से बाहर गया, इसके रिस्पॉन्ड में कुछ इंटरनेट ने अलाउ किया, अगर वो आपके कंपनी के पॉलो जो भी फायरवॉल है उसको अगर उसके स्टैंडर्ड पे मीट करती है, देन इट इज गोइंग टू इनसाइड। अगर वो नहीं मीट करती है तो वहीं पे ये डेड हो जाएगा, अगेन से फिर से ये डेड हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फायरवॉल्स। सो अब मैं बात करता हूं कि चाहे किसी ब्रांड का भी फायरवॉल हो, नॉट ओनली द पालो अल्टो फायरवॉल, मैं बोलता हूं किसी ब्रांड का, आपका सिस्को का भी फायरवॉल है। मैंने जैसे बताया था कि बेसिक नीड, जैसे फोन का मैंने एग्जांपल दिया था, फोन में आपको बेसिक नीड क्या होती है? कैमरा होना चाहिए, राइट? कैमरा के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास इंटरनेट उसमें चलना चाहिए, ठीक है? इंटरनेट के साथ आप रैम देखते हो, रैम के साथ उसका स्टोरेज देखते हो, यही सारी चीज देखते हो ना आप। प्रोसेसर देखते हो, और क्या देखते हो आप? यही 3-4 देखते हो। तो ये हर फोन में मैंडेटरी होता है। दिस ऑल फीचर विल बी मैंडेटरी फॉर द एवरी फोन्स। सिमिलरली एवरी फायरवॉल्स हैविंग सम बेसिक फीचर्स, बेसिक और एडवांस ही फीचर बोल दो, कि उसके अंदर आपके पास नेक्स्ट जनरेशन का फीचर होना चाहिए जिसमें वो आपके किसी भी कंटेंट को, आपके इंफॉर्मेशन को, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्शन दे सकें। तो अब बात आती है कि मैं क्यों पालो अल्टो फायरवॉल ही खरीदूं। अच्छा, उससे पहले मैं जाने से आप लोगों का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम स्पीकिंग 45 मिनट। आप लोगों के क्वेश्चंस क्या है? पूछो। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लग रहे हैं। जैसे जो सर फायरवॉल है, तो हाँ इसमें कंपनियां तो अब अलग अलग यूज कर रही हैं फायरवॉल, बिल्कुल। तो हम कितनी करेंगे? हम कितनी करेंगे? देखो, आप फोन आप यूज करते हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ तो जी सर। मार्केट में कंपनियां कई सारे के फोन बेचती हैं, तो आप कितने फोन जी, यूज करते हैं? आप बताइए। एक करते हैं, बहुत सारे करते हैं? यूज तो एक ही करते हैं सर। बस, तो यही आंसर है। कंपनियां भी एक ही फायरवॉल यूज करेंगे, अब वो डिपेंड करता है कौन सी करेंगे, है ना? नहीं, तो आपने ऐसे मतलब मेरा क्वेश्चन सर ये है कि एज ए इंटरव्यू, जैसे हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, एज ए, अच्छा अच्छा। जैसे हाँ हमने हाँ कभी फायरवॉल यूज करी नहीं है पर हमें नॉलेज है फायरवॉल की, पर हाँ। वहाँ रिक्वायरमेंट वो कह रहे हैं कि आप वहाँ रिक्वायरमेंट उस चीज की है, तो उसको फिर कैसे फेस करेंगे? मतलब क्या रिक्वायरमेंट है कि मतलब फायरवॉल दे वांट टू? मान लो कि जैसे हमने पालो अल्टो कर लिया, हाँ हाँ। वो दूसरी कंपनी कह रही है कि हम आपको रखने को तैयार हैं पर आपको FortiGate आनी चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। तो मतलब यू वांट कि मतलब कि मुझे कौन सी फायरवॉल सीखनी चाहिए और कौन सी नहीं सीखना चाहिए, अब ये बोल रहे हो? ऐसा कुछ आप पूछना चाह रहे हो? हाँ, मतलब कि जैसे हम इंस्टेंटली मतलब हम उस जॉब को ले सकें। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, देखो।
जो मार्केट है ना उसके अंदर जो FortiGate फायरवॉल है वो है Palo Alto, फिर आपका चेक पॉइंट है, और तीसरा जो है आपका FortiNet की फायरवॉल है। ठीक है, 3 ही फायरवॉल हैं जो आपके लीडर्स हैं जो मार्केट के, जो सबसे FortiNet है या FortiGate है सर? वो दोनों ही एक वेंडर है, एक प्रोडक्ट है, दोनों एक ही चीज है। FortiGate एंड FortiNet सेम थिंग। ठीक है, सो देखो FortiNet इज ए कंपनी, FortiGate इज ए प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये दोनों से कंफ्यूज मत हुआ करो। FortiGate ये देखो यहाँ पे देखो, FortiNet Palo Alto, मैं इसलिए बताया कंपनी का नाम मैंने बताया ताकि ये 3 वेंडर्स हैं, FortiGate इज ए प्रोडक्ट, तो ये तीनों वेंडर मार्केट के लीडर हैं। सो पहली बात, जो लीडर होता है उसी की पूछ होती है, बाकी लोगों को कौन पूछता है आजकल, राइट? सो एवरीवन जस्ट टॉक अबाउट द लीडर्स कि भाई हु इज द लीडर, उनके पीछे कैमरा घूमते रहता है, उनकी स्टेटमेंट टीवी पे दिन भर दिखाते रहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो जिसकी जितनी अच्छी लीडरशिप रहेगी, जिसकी जितनी अच्छी प्रेजेंस रहेगी, जिसकी जितनी अच्छी स्किल्स रहेगी, लोग उसको ही सेलेक्ट करेंगे ना अपने लिए। कौन नहीं चाहेगा कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहूं? सो दीज आर द लीडर्स। सो अगर आप तीनों में से कोई फायरवॉल पढ़ते हो, राइट, so you will get the equal opportunities. Okay. This is the first thing. Now out of leaders, ये तीनों के लीडर के बात करते हैं, तो तीनों मेरे हिसाब से मैं अगर नंबरिंग दूं तो 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रस्ट में, मेरे से ऑनेस्टली पूछो तो 19-20 का ही फर्क है, राइट? समवन इज 20, समवन इज 19, बट स्टिल Palo Alto इसलिए थोड़ा सा फेमस ज्यादा मार्केट में है कि ये तो सबसे इजीएस्ट फायरवॉल है लर्न करने में, वन ऑफ द इजीएस्ट फायरवॉल लर्न करना, कॉन्फ़िगर करना, ट्रबल शूट करना। एंड चेक पॉइंट एक्चुअली Palo Alto से पहले आया था, बट जो इनका फाउंडर हैं निर्जुक, राइट, देखो यहाँ पे, सो निर्जुक अर्लियर ही वाज द एम्प्लॉय ऑफ द चेक पॉइंट। सो चेक पॉइंट से निकलकर ही इन्होंने Palo Alto बनाया। सो यू विल फाइंड मेनी सिमिलरिटीज फ्रॉम चेक पॉइंट एंड द Palo Alto। तो अगर दोनों में से कोई एक फायरवॉल आपको आता है तो दूसरा अपने आप ही सीख जाओगे, क्योंकि बहुत स्लाइटली डिफरेंस है इसके अंदर। तो आपके अगर Palo Alto सीखते हो तो चेक पॉइंट आप बाय डिफॉल्ट, आपके लिए कोई ज्यादा चैलेंज होगा नहीं। थोड़ा बहुत भी अगर हाथ पैर मारोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो यू विल गेट दैट। अब रही बात FortiNet की, FortiNet नो डाउट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड बहुत ज्यादा मार्केट इसका कैप है, बट FortiNet को आपको थोड़ा सा टाइम देकर सीखना पड़ेगा, और FortiNet भी आप सीख लेते हो तो भी आपको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब बात आता है कि मैंने Palo Alto सीख लिया, FortiNet सीख लिया, मुझे जॉब में बोला गया कि आपको कर पाओगे नहीं करो, आप खुले बोलो कि मैं कर लूंगा, जस्ट गिव मी द अपॉर्चुनिटी, मुझे फायरवॉल के कॉन्सेप्ट पता है। क्योंकि जो आप सिलेबस करोगे, कोई भी इंस्ट्रक्टर है, अगर वो आपको बेसिक, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब चीजें आपको क्लियर होती है, तो वही बता रहा हूँ कि मोबाइल फोन कोई भी आप खरीदो, बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैमरा, स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए कैमरा फोन के अंदर। अगर ये सारी चीजें आपको पता है, कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं, तो ये अगर आईफोन का 4 फीचर आपको यूज करने आता, तो अगर सैमसंग में दे दूंगा तो नहीं कर लोगे? आप कर लोगे। बस वही है कि आपको थोड़ा सा 1-2 दिन अटपटा सा लगेगा, यू विल फील लाइक कि थोड़ा सा मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है, बट यू विल डू दैट। सो बेसिक इज कि योर फायरवॉल फंडामेंटल शुड बी क्लियर। आपको अगर फंडामेंटल्स क्लियर है कि सिक्योरिटी रूल किस लिए यूज करते हैं, राउटिंग क्यों यूज करते हैं, पॉलिसी क्यों यूज करते हैं, राइट, एंड नेट क्यों यूज करते हैं, इफ यू नो दीज ऑल थिंग्स, तो आपके इन रिगार्ड ऑफ कोई वेंडर्स, मैं चैलेंज करता हूं, कोई वेंडर्स यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। बस थोड़ा सा आपको हाथ पैर मारना है, राइट? ओके, सो आई होप you happy with the answer. Any yes, Mr. Khan, please tell me. या सर, हेलो। एक मिनट वालिद, एक मिनट, मिस्टर खान है, हैंड रेज किए हैं, पहले खान के क्वेश्चन लेते हैं। बताइए खान। सर एक क्वेश्चन था, थोड़ा मुझे 2 मिनट चाहिए। हाँ बताइए। करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मेरा बैकग्राउंड है राउटिंग स्विचिंग का है। मैं मतलब राउटिंग स्विचिंग L2 लेवल, L3 थोड़े से लेवल, उसमें हम काम कर रहे हैं। हमने बोल दिया कि ठीक है, सिक्योरिटी भी हमसे आती है, हमें भी इसमें 3-4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी में। Palo Alto में इतना एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसमें उन्होंने क्वेश्चनिंग किस तरह से क्वेश्चन करते थे, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, IP से, क्रिप्टोग्राफी क्या, कास्ट रेडियस, और आपके एल्गोरिथम, हैश एल्गोरिथम, सिमेट्रिक एल्गोरिथम, ब्लॉक साइफर, इस तरह के क्वेश्चनों को तो इसमें कवर हो। अब हमने Palo Alto करना शुरू करी और हमें पता भी चल गया कि राउटिंग कैसे होती है, उसकी नेट कैसे लगता है, उसमें कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो चीज हमने पॉइंट सीख भी ली आपकी 30 घंटे की क्लास में। लेकिन ये सब चीजें कवर कैसे होंगी उसमें? मतलब हमें बैकग्राउंड तो है नहीं। देखो अब दो चीजें समझो, 2-3 चीज आपने नाम लिया। जैसे आपने नाम लिया कि हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है, राइट, हैश क्या होता है, राइट, आपने पूछा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, राइट, क्रिप्टो शॉर्ट में लिखते हैं, IP से आपने बोला, राइट, आपने
3 चीजें बोला और प्लस आपने टेकैक्स बोला और कुछ आप रेडियस एल्गोरिथम होती है, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक एल्गोरिथम, हाँ रेडियस साइफर का होता है ब्लॉक से, हाँ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक एल्गोरिथम राइट और साइफर होते हैं ब्लॉक साइफर। हाँ मैं बता रहा हूँ सिमेट्रिक असिमेट्रिक के अंदर साइफर आप क्या जाएंगे। अब देखो इसके अंदर ट्रिपल ए टेकैक्स के अंदर ही हो गया ठीक है। अब देखो समझो बात को, जब आप बात करते हो टेकैक्स रेडियस ट्रिपल ए ठीक है, अगर आपको ये सीखना है कैसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनको रियल टेस्टिंग करना है, तो आपको कंप्लीट अगर आपको सीखना है तो इसके लिए रियल डिवाइस चाहिए और आपको इसके लिए सीसीआई करना पड़ेगा। सीसीआई की लैब के टास्क हैं। पहली बात, कॉन्सेप्ट आपको सीसीएनपी एनकोर मिल जाएगा राइट, बट लैब टेस्टिंग करनी है इनकी, तो दीज आर द रियल डिवाइस। टेकैक्स आईज की डिवाइस चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए और आपको रियल डिवाइस चाहिए जो सीसीआई लैब के पार्ट है। तो अगर आप सीसीआई लैब करना चाहते हो तो आपको उस लैब के साथ टेस्टिंग मिल जाएगा, बट इसकी जरूरत है नहीं। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है कैसे होती है, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन, जो सीसीएनपी एनकोर में आप बड़े आसानी से सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हो गई आपकी बात 3 चीजों की, ट्रिपल ए रेडियस एंड टेकैक्स के। क्लियर 3 चीजें ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि पोलो अल्टो में क्या ये सारी चीजें कवर होती हैं, क्रिप्टो हैश। तो देखो आईपी-सेक जो मैं बताऊंगा, आईपी-सेक जो मैं पढ़ाऊंगा ठीक है, इसमें मैं सीसीआई की बुक से ही पूरी आईपी-सेक का आपको फंडामेंटल बताऊंगा, जिसमें आपका हैशिंग एल्गोरिथम क्या होता है राइट, हैश को यूज करते हैं, आपका इंक्रिप्शन क्या होता है, आपका डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है राइट। तो ये आपका क्रिप्टो आईपी-सेक, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको आईपी-सेक में 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने वीडियो भी देखा है तो उसमें अगर आईपी-सेक सेशन करना और इट विल बी द कवर्ड हैश क्रिप्टो आईपी-सेक, ये होना ही होना है, नहीं होने का कोई चांस नहीं कि नहीं होगा राइट। इसकी मैं अगर कुछ मिसिंग है तो यू जस्ट कनेक्ट ऑफलाइन या अपकमिंग जो भी क्लास होगी उसमें मैं बता दूंगा आपको, या स्पेशली मैं इसको नोट कर लूंगा अगर कुछ मिसिंग है तो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि अभी इसी हफ्ते हमने एक क्लासेस की हैं और हमने पूरा, कुछ लोगों ने इस बैच पिछले क्लास के पूरा कवर हमने बहुत डिटेल में किया है ठीक है। दिस ऑल गोइंग टू बी कवर राइट। सिमेट्रिक असिमेट्रिक की बात राइट, सो ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है जो मैं कराता हूँ इसके अंदर, और इसकी की के बारे में भी मैं बताता हूँ जो हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट है। देखो ग्लोबल प्रोटेक्ट हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे, सॉरी ग्लोबल एसएसएल डिक्रिप्शन। सो एसएसएल डिक्रिप्शन की जब आप बात करते हो तो लेट मी शो यू, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, कहाँ गया पैन ओएस 9.0, कहाँ है ये है क्या, एक सेकेंड मुझे दो ओवरव्यू, 9.0 10.0 है ये, 10.0 है क्या, PCSA और PCSE दोनों ही है सर? हाँ हाँ दोनों ही है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पहले इनको थोड़ा बता दो, दिखा दूं कि आप टेंशन मत लो, इसकी मेरी गारंटी है, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में सिखा दूंगा अगर इसकी सीखने की चेष्टा है तो ठीक है। पूरा एक एक लेवल का पैकेट फ्लो साइफर कैसे एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जो इंटरव्यू का जो एक क्वेश्चन जो कई लोग पूछते हैं ना, अपने ईगो पे ले जाते हैं, वो लोग पूछते हैं ऐसी चीजें। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट एसएल डिक्रिप्शन के अंदर होता है, तो इसके अंदर आपको नहीं सीखना है जो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक की का जो आपका जो कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हो, एसएल डिक्रिप्शन के अंदर नहीं सीखना है। लेकिन अगर मैं किसी को सीखना है तो देयर इज अ वेरी डिटेल्ड और वेरी कॉम्प्लेक्स पैकेट फ्लो, जिसी का ये शॉर्ट है उसी का ये शॉर्ट है। अब इसमें जो क्लाइंट ये होता है ना, इसी के अंदर साइफर जाते हैं, आपका हैंडशेक होता है, वो साइफर की चेक करता है, उस साइफर की वगैरह चेक करने के बाद वो फिर एल्गोरिथम भेजता है, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक की जनरेट होती है, देन इट इज गोइंग टू बी फुल्ली ऑथेंटिकेटेड। तो दिस इज गोइंग टू हैपन, अगर आपको सीखना है तो मेरे साइड से ओपन है, आई एम टेकिंग लाइक द स्पेशल नोट कि मैं बता दूंगा ठीक है अगर स्पेसिफिक, लेकिन बाकी जो चीजें हैं दैट डेफिनेटली गोइंग टू बी कवर। क्लियर? मेनली सर प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मतलब मुझे सीखने में जो भी यहाँ पर क्लास भी कर रहा है, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, आपके आवाज आपके अभी भी कट रही है। हाँ हाँ बताइए। सर मैं कह रहा था कि मेनली जो भी इन्वॉल्व कर रहे हैं लड़के, कोई बात नहीं, थोड़ा स्टेबल नेटवर्क में आ जाओ। हाँ जी, आप कोई और खान जी, वालिद जी कुछ पूछ रहे थे, विनायक, हर्षित, कोई आप लोग पूछ रहे कुछ क्वेश्चन? मीनवाइल मिस्टर खान अपना फिक्स कर रहे हैं माइक। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Yeah, हाँ हेलो Siddhartha this side. Hello? Hello? Hello, am I audible?
Yes, now you are audible. Yeah, sorry for late. Actually, I'm late class. No And, problem, no problem. yeah, one more thing. Actually, this is regarding global product, right? Lab Yes, and right. yeah, the application method, the SAML radius and TechX regarding everything are covered here. No, SAML radius TechX. So that's the same thing I was just talking. So if you have to do the integration with the servers, you having a server that I'm going to tell how it is going to be configured. But in our lab, we don't have the radius server, we don't have the TechX server. So that is not possible. I can do the live configuration. But yes, if your network having these all devices available, so I can tell you how this can be integrated, what configuration you need to do. And apart from that, global protect complete configuration with the testing, I'm taking a guarantee I'll do that. Complete configuration, because right now you can see this is the global protect lab and it is up and working completely. So here you'll find everything is configured. So this is going to be configured, but integration of the TechAx, SAML or radius server, if you want to know, there is a very small step you have to do, which I'll tell you. Okay. Okay. Thank you. Yeah. Welcome. And before what you are discussing, I don't know. I joined now only. No problem. We discussing some basic firewall fundamental. We'll discuss the global product later because okay. So we are discussing some basic fundamentals of the firewalls. Okay. Yeah, Any sure. other question, guys? Thank you, Siddharth, for asking the question. हेलो सर। Yeah. Yes, Walid. Tell me. मैं पूछ रहा था सर कि जैसे PCNAC और PCNSA दोनों कंबाइन करके पढ़ाई है, अदरवाइज ये अलग अलग दोनों डिफरेंस में क्या है सर, मुझे कंफ्यूज बता दें आप। Okay, so PCNSA is the Palo Alto Network Certified Network Security Administrator. This is the PCNSA. PCNSA is the Palo Alto Network Certified Network Security Engineers. So ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपको PCNSA plus PCNSC, this is the associate level, this is the advanced level, ये दोनों ही मैं कवर कराऊंगा। अगर आप जाते हो, अगर आप इसके सिलेबस को ऑफिशियली एजुकेशन पे देखते हो, पालो अल्टो एजुकेशन सर्विसेज पे, ठीक है, सो आप लोग सर्च कर लेना एजुकेशन सर्विसेज, ये पोर्टल है, मैं देता हूँ अभी आप लोग को। सो यू विल गो इन द नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत ओपन है, हम कुछ छुपाते तो है नहीं, सब कुछ यहाँ पे सिलेबस। यहाँ पे देखो आपको पीसीएनएससी का सिलेबस है और एक आपको यहाँ पे पीसीएनएससी का भी सिलेबस मिलेगा। कहाँ है, कहाँ गया? देयर शुड बी पीसीएनएससी सिलेबस आल्सो। अभी कल ही तो देखा था हमने, ये रहा देखो। हाँ, सो दिस इज द पीसीएनएसएस सिलेबस। तो इस पे क्लिक करोगे तो इसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस आपको मिलता है। इसमें बेसिक चीज आपको मिलेगी कि भाई पालो अल्टो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, डॉस, ऐप आईडी, वाइल्ड फायर, इसका सबका मतलब समझना, छोटी मोटी लैब करनी है आपको। बट इफ यू वांट टू डू द एडवांस लेवल तो आपको पीसीएनएससी करना पड़ेगा, जिसके अंदर पूरी नैट वगैरह, पैनोरामा, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल प्रोटेक्ट, सब कुछ आपको समझने को मिलता है। सो वो हम करेंगे पीसीएनएससी के अंदर। तो इसलिए पीसीएनएससी इज द मोर एडवांस। एंड सर्टिफिकेशन जो है आपको इसको नहीं देना है, जस्ट सेव योर मनी, इसको दे देना सर्टिफिकेशन। क्या हम पैनोरामा कितना लेवल, मतलब कौन से लेवल पे, कैसे, तो उसका कुछ? तो पैनोरामा इज समथिंग कि ये जितनी भी इंटायर हमारे कोर्स सेशंस हैं, राइट, एवरीथिंग 100% इज गोइंग टू बी डन। पैनोरामा इज लाइक वी हैव अ लैब, राइट, पैनोरामा की लैब हमारे पास है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द लाइसेंस पैनोरामास, राइट। सो ड्यू टू द अनलाइसेंस पैनोरामा हम उसमें रियल डिवाइस को अटैच नहीं कर सकते। बट आई विल टेल ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कि कैसे आप प्री रूल बनाते हो। मैं एग्जैक्टली वैसे ही सिमुलेट करके बताऊंगा आप लोगों को, जैसे आपको रियल डिवाइस में अगर मिले तो आप लोग उसको कोरिलेट कर सकते हो, या आप किसी के पास अगर रियल पैनोरामा हो, अगर वो टेस्ट में देना चाहे तो हम लैब में उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लैब इज अवेलेबल, पैनोरामा डिवाइस इज अवेलेबल, बट ओनली इंटीग्रेशन लाइक द रियल वाला इंटीग्रेशन वो नहीं हो पाता है, ताकि हम उसको समझ पाए कि भाई कैसे बात कर रहा है। बाकी इसके अलावा जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, प्री रूल्स, पोस्ट रूल, आपका डिवाइस टेम्पलेट, और आपका जो डिवाइस ग्रुप कैसे बनाना है, आपको कैसे पालो अल्टो फायरवॉल को पैनोरामा में इंटीग्रेट करते हैं, पैनोरामा कैसे पालो अल्टो इंटीग्रेट करता है, तो 90% कॉन्सेप्ट यू विल गेट फ्रॉम हियर। ओनली टेस्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज उसके लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस इज वेरी कॉस्टली, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक हम उतना बियर कर सकें फिलहाल। सर ये ईव के अंदर करेंगे या फिर जीएनएस पे करेंगे? These are all DNS based. This is all GNS. Sorry, this is eve के बेस, सब eve के अंदर ही होगा, और आप सबको लैब मिल जाएगा, लैब का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे इस तरीके से हमारा अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग जैसे URL जैसे यहाँ मैंने ओपन किया है,
तो आप लोग भी अपने ब्राउजर पे URL ओपन करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, और यहाँ पे जाकर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, राइट। तो यू विल गेट एन एक्सेस ऑफ द लैब्स, कि इस लैब के अंदर आपको पूरी फायरवॉल्स के बारे में टोपोलॉजी अगर देखो पहले से बनी हुई है, तो इसमें आप जाकर जो मैं क्लासेस में कराऊंगा आप एग्जैक्टली सेम टोपोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेंगी, सेम टू सेम जो मैं कराऊंगा। जैसे साइड टू साइड VPNs का है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ग्लोब प्रोटेक्ट का आपको मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे एक्टिव पैसिव एक्टिव पैनोरामा का, कंटेंट आईडी, सब सारी लैब्स जो मैं बताऊंगा वो आपको सेम एज इट इज करनी है लैब्स, राइट। सो उसमें कोई टेंशन नहीं होनी है आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो इसको हम जैसे इसको हम अपना अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये आपको सिस्टम में डाउनलोड, ये URL से होता है, कैसे डाउनलोड करोगे? इसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, अगर इस लैब को चलाना है तो सिस्टम मस्ट बी हैविंग 128 GB रैम चाहिए उसके लिए, या 64 GB तो मिनिमम चाहिए आपको रैम के साथ, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, और इसको इंस्टॉल करना सिस्टम में मेंटेन करना इट्स नॉट इजी टास्क, आपको पूरा सेटअप चलाना मतलब इसमें बहुत इंजीनियरिंग लगती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल ये URL मिलेगा आपको, इसको URL को अपने सिस्टम में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जस्ट यू हैव पुट योर यूजर नेम पासवर्ड, और आपको सारी टोपोलॉजी मिल जाएंगे। आपको ऑन करनी है डिवाइसेस, आपको अपना काम करना है बस, जैसे ही काम खत्म हो जाए आपको ऑफ कर देना है। तो क्या 24/7 लैब कैसे है, मतलब? सो लैब इज ऑलवेज गोइंग टू बी अवेलेबल 24/7, राइट। आपको मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस टाइम पे करो, आपके पास लैब एक्सेस हमेशा रहेगा, राइट। एंड आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप यू कैन डू दैट लैब में कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि आपको कि 2 घंटे 4 घंटे की लैब नहीं मिलेगी, इट इज 24/7 हमारी लैब। कई बार हमारा जैसे मेंटेनेंस होता है, 1-2 बार डाउन टाइम हो जाती है, वो इंटरमिटेंट होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा था तो बीच में 1-2 दिन हमारी लैब डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि बहुत ज्यादा पावर आउटेज हो गई थी, तो हमारा वो क्या बोलते हैं जो सर्वर्स बैकअप था दैट वाज द फिनिश्ड। बट यस, ऐसे कभी कभार होता है, वंस इन अ वाइल। हाँ, वो बियरेबल है, आप लोग कर लोगे, उतना सपोर्ट करोगे सबको ही, मेरे तो को भी। एक्सेस कब तक मिलेगा सर? ये पढ़ने के बाद मिलेगा या तो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, द 3 months you will get an access, 3 months you will get an access. और आफ्टर 3 मंथ के बाद सर? After 3 months you just have to talk with the support team and they will tell the process. For 3 months you'll get the access. 3 महीने का, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं दिया जा सकता ना, क्योंकि अगर सबको अनलिमिटेड दे देंगे तो फिर तो मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। नहीं बिल्कुल सर, ये हाँ, यू आर एब्सोल्युटली तो आई राइट। थिंक 3 months इज एनफ 24/7 ना, आई थिंक इतना ज्यादा तो आई थिंक बहुत है आप लोग के लिए करने के लिए। बिल्कुल। पंकज सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी गौरव, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने प्लान चेंज कर दिया, SD-WAN से मैं पालो अल्टो ही सीखूंगा, और फिर अच्छा। पालो अल्टो का सर्टिफिकेशन भी मैं करूंगा। मैं अभिषेक जी से ऑलरेडी बात कर रखा हूँ इसके लिए। अच्छा, और मैं पूछना चाहता हूँ, ये कब से आपका स्टार्ट होगा? मतलब कब से एक रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ये डेमो सेशन है? अभी देखो, अभी हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट वीक से हमारा रेगुलर, देखो आज हमारी क्लास हुई है, फिर मंडे को क्लास होगी हमारी, राइट। मंडे को क्लास होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक मंडे को, सॉरी मंडे ट्यूसडे को 1 को क्लास होगी हमारी, ठीक है। 1 अगस्त को क्लास होगी, और मान के चलो 1 अगस्त की जो है, उसके बाद से 7 अगस्त से हो सकता है कि इनिशियली हम स्लो इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लोग बेसिक फंडामेंटल में बताऊंगा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, तो उसमें टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम 1 या 2 क्लासेस सिर्फ लें, लेकिन 7 अगस्त से ये 100% मेरी कमिटमेंट है कि ये क्लास आपका रेगुलर चलेगा, 4 डे इन अ वीक चलेगा क्लास, ठीक So है। time is fixed 8 p.m. So I want to know one thing here. If you just share the logic and all the details, so by the same time I need to configure the lab with the device, or after that I need to configure the same? See, what I would suggest कि इनिशियली जो हम क्लासेस करते हैं तो 4-5 क्लासेस ऐसे होती हैं जिसमें हमें कोई लैब की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे आज की क्लासेस हुई, ठीक है। अभी 2-3 क्लासेस मैं ऐसे बताऊंगा आप लोगों को कि 2 या 3 क्लास होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें बहुत मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे ये मॉड्यूल है, पूरा फंडामेंटल से आर्किटेक्चर के बारे में, फ्लो लॉजिक के बारे में, पूरा एक स्टेप हम पैकेट फ्लो के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो पैकेट फ्लो के बारे में समझेंगे कि पालो आल्टो का पैकेट फ्लो क्या होता है। जब आप लोग एक बार मतलब 5 क्लास जब हो जाती है ना हमारी, जो बहुत बेसिक
देन आई विल स्टार्ट विद द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से आप लोगों का लैब स्टार्ट होता है। तो इनिशियली आप लोगों को मोर थ्योरी पे, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज है ना कि आप कितना भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर यू आर नॉट एबल टू से समथिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, यू विल नॉट एबल टू क्रैक योर इंटरव्यूज। सो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Actually, एवरीवन। yes, what I'm saying to, I will be in office for the Monday to Friday every week, So what can I do? I can just because I have just opened in the laptop this one zoom.us, but your screen is not visible to me because of a security reason in the laptop. So I have just tried with the mobile. So it will be okay with the mobile, and after Hello, that I will am I just audible? check with the. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Now you are audible. Hello. Okay, sir. Now audible. Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello. हेलो सर। Hello. Sorry everyone, I believe there is some internet issue happened. Sorry for that. Let me share my screen. Yes. Okay. Binayak, you were saying something. Sorry, Sanjay, you saying something, right? Yes, I'm Gaurav here. Yeah, Gaurav. Yes, Gaurav, you're saying sorry for that. Yeah, Yes, Gaurav. तो पंकज जी, मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ मोबाइल के थ्रू। आफ्टर दैट मैं चेक कर सकता हूँ लैब एक्सेस विद इन द लाइक फ्री टाइम लाइक। So during the classes, you don't need to do any labs. This is my highly recommendation. आप during the classes आपको सिर्फ अपने notes पे focus करना है. You just have to take notes. आपको notes बनाने हैं, आपको bullets points notes करने हैं अपने. After the class, you can do labs. जब भी आपको टाइम मिले। मैं कभी क्लास के समय किसी को लैब एक्सेस देता भी नहीं हूँ, बंद कर देता हूँ, क्योंकि क्लास के समय आप बिल्कुल फोकस करो क्लास पे, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपके पास सही है ना, यू कैन जस्ट डू दैट, एक्सेस लेटर ऑन। तो वो सारी चीजें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप आराम से यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। And in the next class, if I have any questions, so I will just speak with you and take an answer. Definitely, likewise today everyone is speaking every day in every class. Any question are welcomes. There is no problem from my side कि आपने question क्यों पूछा, ठीक है। Because I don't know the security, nothing I know it in the security actually. आज ये समझ में आया कि फायरवॉल क्या होती है कि ये बताओ, कि नहीं अभी तक समझ में आया कि हाँ, व्हाट इज द फायरवॉल? हाँ, मुझे फायरवॉल समझ में आ गया है, तो मैं इसको स्टार्ट भी करूंगा। I have access of Udemy for the all courses, so I will try with the Udemy as well as with the lab access with this Hindi module. This will be good for me. Okay. तो ये कितना मंथ का कोर्स है? So this course is going to be will start in the September, means August, and this is going to finish in October, by end of the October. 2 months का? हाँ, almost 1.5 or 2 months चलेगा कोर्स है आपका। ओके। और एक्चुअली सर मेरा जो टाइमिंग है सर वो 8:30 हो जाएगा सर आते हुए, तो हाफ एन आवर का सर कैसे होगा? आप इसको, आप क्या मैं बताऊं कि जस्ट हैव टू मैनेज। 1-1.5 महीने की बात है, तो देख लो कुछ अगर मैनेज करते हो कि यार, मतलब कि ये टाइमिंग हमने बड़ा We can सोच try by the mobile, I think. हाँ, We can मोबाइल try भी ट्राई, हाँ मोबाइल से कर सकते हैं। बाकी तो if there is any notepad also. हाँ, you can just use the mobiles, और जो छूटा है you can recap in the free time, and next day आप आगे क्वेश्चन पूछ सकते हो रिकॉर्डिंग देखने के बाद। This is what I can suggest, ठीक है विनायक। सर कितने घंटे का सर वो है सर? क्या क्लास कितने घंटे की है? 1.5 आवर की होगी डेली क्लास। 9 बजे तक 9:30 तक हम पढ़ेंगे, मतलब यही हमारा टाइमिंग रहता है। जस्ट 90 मिनट इज द एनफ टाइम, मतलब बेस्ट टाइमिंग होता है लर्निंग के लिए। उससे ज्यादा वीकेंड में हम स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटा में करना पड़ता है, बट वीक डेज आई थिंक डेली क्लासेज, उसमें भी हम 4 डेज ही क्लास करते हैं, 5 डेज भी नहीं करते हैं। सो मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे हम हॉलीडे रखते हैं। सो यू गाइज कैन ऑल्सो फील एंजॉय फ्राइडे को, सैटरडे संडे 3 दिन आप लोग थोड़ा सा मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्स खत्म करना इज नॉट आवर प्रायोरिटी, ठीक है। You guys should learn something. This is our priority. ओके। हाँ। पंकज जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था, ये जून क्लासेस आपके SD-WAN के बंद हो गए कि नहीं, मतलब कंप्लीट हो गए कि नहीं? नहीं, इस वक्त तक कंप्लीट हो जाएगा SD-WAN के क्लासेस इस वीकेंड। ओके। सर SD-WAN में सर आप ही कराएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं SD-WAN भी कराऊंगा और मैं CCNA, CCNP इनकोर, NRC आपका, और नेक्स्ट मंथ आप लोगों का चेक पॉइंट भी आ जाएगा, राइट? सॉरी, चेक पॉइंट, FortiGate फायरवॉल आ जाएगा एंड Palo Alto भी। क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ाते हैं क्या सर आप? SD-WAN का सर ये जो कोर्स है सर, ये CCNA वो सिस्को का 415 है। हाँ हाँ, CCNP इनकोर के बारे में बात कर रहे हो क्या आप? SD-WAN का सर। हाँ, SD-WAN का कोर्स आईडी आपका ये है, देखो ये है आपका ENSYS, इसको SD-WAN, इसको SD-WAN सिलेबस। सर SD-WAN का न्यू बैच कब स्टार्ट होता था? एक मिनट मुमताज बता रहा हूँ। तो ये आपका 415 है, ये आपका ये वाला एग्जाम है, देखो ये वाला। So Mumtaz, the SD-WAN batch will be started by this month only. Okay, very soon you'll get an update. Okay, this month आपके SD-WAN के batch start हो जाएगा. Yes, so we are good till now. I have one question. So Yes. do you guys help with the Palo Alto certification or not? Do we get Palo Alto? Like, do you guys help us with the Palo Alto certification? Yeah, definitely. We can have a separate discussion on it, how we can pass the Palo Alto certification. I can provide officially some for every book. So you can see these are the books. So let me just show from here. So you'll get like whatever you want to do certification. Officially certification guide I have, like you want to go with the PCNSA, so you just go with the PCNSA. If you want to go with the PCNSA, you go with the PCNSA. So these are actually Palo Alto books. So I'll give this book access, that is for everyone. And in these books, you'll get each and every topic in very detail, along with the what type of the question is going to be asked in the exams. But if you are really planning for the exam, so I would suggest not going in the hurry, just focusing on these simple all exams questions. You just prepare yourself for the PCNSA and PCNSA both and complete all the questions sample tests. See all the sample tests. And if you are scoring 80-90% from these samples test, along with I will provide some other question bank also. So just complete those. And if you feel I'm very sure about that, then you go and book the exam. There's no problem. But yes, you'll get everything. Every sample test questions are available in these books. So you'll find these all question and answers. Along with that, I'll tell you in a separate session without recorded session. If you want use some other way, I can tell that also. But that is, it's your choice how basically you want to do that. But exam and concept both are two different things. Yes, sir. So passing exam is like you can do without any knowledge right now in the market. But I would not recommend for that. You just complete and make sure you able to complete 90%, all correctly from PCNSA and PCNSC. Then you book your exam. And then you are the real PCNSA engineer or PCNSA engineer. So this is my recommendation, Annie. Okay, Annie? Thank you. And also the class will be this, the class, is it going to be same time that we are in right now? Or it's not? Yes, yeah, is it the same time? When you started the class, this is the time. And right now you can see in our place, it is happening 1916. So 14-minute plus you can add on it. So the class will start like for our time 8 p.m. India time, which is I believe for you it's around what time you started? At 10 a.m. morning or 11? I think it was 10 a.m. 10 a.m. morning, right? So 10 to you just think about 11:30 morning, right? Okay, so it's for like 1.5 hour class. Yes, 1.5 hour class, Monday to Thursday. Monday to Thursday. Okay, got Yeah. it. Thanks. Yeah. और सर ये SD-WAN की कब होंगी सर क्लासें? So SD-WAN की classes. So SD-WAN की class will start. So this batch will going to finish by this week. So probably will start by 12 and 13. 5th or 6th ko I'm not going to take new batch because I have to some plan something else. So टाइमिंग्स क्या होता सर? SD-WAN टाइमिंग्स. So SD-WAN timings we have morning में 10 a.m. IST, 10 to 10 a.m. IST to 12:30 p.m. IST. So this is the timing for the SD-WAN, Saturday and Sunday.
So this is the minimum timing, इतना तो हमें करना ही करना है, and we can extend 30 minutes more because if हम break भी लेते हैं 15 मिनट का 10 मिनट का क्लासेस में, so we can go like 3-hour session sometimes, but yes definitely हम 2.5 घंटे तो पढ़ाई करेंगे, 2.5 hours, right? Okay, course period time sir, कितने months? 1 or 2 months? This is going more than 2 months because it's a weekend, so 2.5 months minimum you can think about it. Okay. सर मेरा क्वेश्चन गुड इवनिंग सर। Yes, yes. ये Yes. कि सर मुझे ना मतलब मेनली आईएसपी का एक्सपीरियंस है, जो आईएसपी में राउटिंग स्विचिंग उसका एक्सपीरियंस है, और अभिषेक सर से बात हुई थी, वो कहते हैं कि पालो अल्टो कर लो, बेनिफिट रहेगा, लेकिन मुझे ना मतलब सिक्योरिटी का बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेनली बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के, वो तो रियल सिनेरियो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितने पालो अल्टो लगे हुए हैं, कैसे कनेक्टिविटी हो रखी है, कैसे करा So हुआ है। this is the what these all classes and जो लैब टोपोलॉजी आप लोग देख रहे हो, these are the not something कि ये लैब के हिसाब से बनी हुई है, these are the real scenario based टोपोलॉजी, जितनी भी टोपोलॉजीज देख रहे हो ना, these are the real scenario based। और मैं जस्ट आप लोग को वर्बली यही बोल सकता हूँ कि यू विल फील कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, और ये सारी रियल टाइम बेसिस पे सिनारियो जितने भी हैं, इंटरनेट पर ट्रैफिक कैसे जाता है, एक्चुअली वही चीजें हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं, उसी हिसाब से आपका पूरा टोपोलॉजी बना हुआ है। सो अगर आप इस पर अच्छे से काम कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि फाइल के इंटरफेसेस क्या होते हैं, इन आउट जोन क्या होता है, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट जोन क्या होता है, एच क्यों हम यूज करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस क्यों होते हैं, राउटिंग कैसे होती है, इसके अंदर सिक्योरिटी कैसे होती है। तो दीज आर द, ऐसा कुछ होगा नहीं कि वहाँ पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे कुछ अलग होगा, सेम चीजें जो आप रियल में करते हो यहाँ पे आप रियल में यू विल नॉट गेट एक्सेस, जब तक आप L3 नहीं बनते हो तब तक आपको पालो अल्टो का एक्सेस भी नहीं मिलता है, राइट? मतलब आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने का, तो कैसे कोई सीखेगा? अब कोई L3 बना तो अपने आप तो सीख के आया नहीं है ना यार, उसको एकदम से तो भगवान ने सिखा नहीं दिया कि राइट यू गो एंड बिकम द L3, उसने भी तो कहीं से स्टार्ट किया होगा फ्रॉम जीरो से। तो दिस इज अ टूल, इसलिए सिमुलेशन टूल बनाया गया। जैसे आप जेएनएस पे सिस्को राउटर कॉन्फ़िगर करते हो, स्विच कॉन्फ़िगर करते हो, यू फील ना कि हम सही में रियल टाइम काम कर रहे हो, आप बीजीपी चलाते हो, मैनिपुलेशन करते हो, पाथ वाइज चलाते हो, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। आपको वही फील आने वाला है, वही आपको उस टाइप का एक्सेस मिलने वाला है, राइट? मतलब जैसे ये कोर्स मतलब एक्सपीरियंस जिनको है उनके लिए भी ठीक है, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ठीक रहेगा? anyone can do this course, anyone, even you are planning, if अगर I am हमसे just basic prerequisite ये है आपको CCNA बेसिक नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए, बस बेसिक नेटवर्किंग इफ यू नो then you can start with the any next generation firewall, not only Palo Alto, any next generation firewall आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ बेसिक नेटवर्किंग इज अ मैंडेटरी, मेरी रिकमेंडेशन है। कई लोग जो हैं बहुत मतलब मिसगाइड करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू मिसगाइड। इसके बिना अगर आप सीखने जाते हो तो मत सीखना मेरी क्लास में, आप इसको मत सीखना Palo Alto firewall। बेसिक नेटवर्किंग अगर नहीं आती है तो आपको, सो बेसिक नेटवर्किंग एटलीस्ट आपको ये पता नहीं राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, कैसे काम कर रही है, इतनी चीजें तो आप पता होना चाहिए ना। सो अगर नहीं आता तो फिर फायरवॉल क्यों सीख रहे हो? आप पहले CCNA करो, राइट? सो दिस इज व्हाट माय रिकमेंडेशन। अगर मतलब 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अगर हम पूछते हैं कि Palo Alto में कितना एक्सपीरियंस है, तो हम बोल सकते हैं कि 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नोबडी गोइंग टू, आप बोलो 8 साल का एक्सपीरियंस, जस्टिफाई करो ना, 2 कोर्स आप करके जा रहे हो PCNA से PCNSC, आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन 3 महीने करके जाओगे, तो व्हाई यू आर गोइंग टू से कि मैं 2-3 साल का, बोलोगे मैं शुरू से Palo Alto में काम कर रहा हूँ, मेरे को Palo Alto डिप्लॉयमेंट आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, जस्ट यू हैव टू नोबडी गोइंग टू चेक कि आप Palo Alto पे कितनी कॉन्फ़िगरेशन की, तो वर्बली पूछेंगे ना कि आपको कंपनी में आपको थोड़ी जाएंगे कि नहीं मिस्टर खान चलो मुझे दिखाओ कैसे आपने कॉन्फ़िगर किया। सो यू जस्ट show your confidence, I am very like passionate and learn about the Palo Alto Firewall, मुझसे कुछ भी पूछना पूछो आप इस सिलेबस से पूरा। पंकज सर मुझे एक चीज पूछना था, अभी मैं एजाइल कनेक्ट का खोला हुआ हूँ, नोकिया SD-WAN का यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज आ रहा है DSCP, हाँ नोकिया नवाज, DSCP remarking profile is there, and there is a uplink IK tunnel. So this tunnel is used in the fire with the use of the fire like Palo Alto Firewall, like Zscaler and Cisco umbrella. मैं बता, देखो DSCP remarking is the QoS concept, ठीक है, is the QoS concept, and uplink IK is a IPsec concept, ठीक है, जो आप Palo Alto में सीखोगे। IK क्या होता है? इंटरनेट की एक्सचेंज, राइट? सो ये आपको Palo Alto में सीखने को मिलेगा। तो QoS आपको सीखना है तो आपको हाँ क्या अपलिंक
uplink QoS is there in that Nokia Novas, and gold is 20%, bronze 25%, silver तो मैं 55%. बोल रहा हूँ कि Is ADS से रिमार्किंग configured है in सर, यस ये Brazil. आपका हाँ नोकिया आवाज पे अपलिंक यूएस होता है, तो आपके अलग अलग सेग्रीगेशन है, वेंडर पे स्पेसिफिक जो अलग अलग बैंडविड्थ है उसके लिए सेग्रीगेशन किया हुआ वहाँ पे. Okay, okay. गुड इवनिंग पंकज सर. Okay, no issue. यस पंकज सर. हाँ जी रवि बताइए. सर today और अगर हम सिक्योरिटी में कर रहे हैं तो एसडीवैन करने से क्या फायदा है? अगर हम उसी जगह सासी कर लें तो सैसी कर ले तो सो सैसी अब क्या आंसर करता हूँ. यस सिड यू आर आस्किंग, जस्ट वेट मैं आंसर कर रहा हूँ. सिड सॉरी सार्थक यू आस्किंग समथिंग. सार्थक और सिद्धार्थ. yeah actually today GP is there or not, GP class is there or not, no. So I'm GP will cover later. Sorry for that. There is a misconfiguration, like confusion about GP classes. So I'm really sorry for that. We'll cover again GP classes. We'll not get enough time to complete that GP classes. Do you want to learn GP only? no I am asking actually the meeting is regarding for that Yeah, GP, right? that's there is some marketing team has done some misguide about the meeting invitations, because yesterday there was a GP class and they mistaken repeat that same Zoom link and the same marketing strategy. But today is something Palo Alto Firewall fundamental class would be there, but somehow I really apologize for that. And I was very angry for those people who make that some kind of mistakes. So there is no GP class, but definitely there is a GP class is going to happen, but not today. So we'll again connect to you. Sorry, And Siddharth. one more thing, that SASE, that means that is under cloud, right? I'm The coming on SASE, SASE. I'm coming on the SASE. So service access services. yes. So the SASE full name is the Secure Access Access services. Service Secure edge. Service Edges. So Service Edge, right? So this is a SASE. So if you talk about the SASE is something like let me just open this particular site. So in That Palo is Alto, a cloud based. yes. Right. So SASE, if you're talking about like in Palo Alto, we having a Prisma as access, which having the SASE solution, right? If you talk about the Zscaler also having a SASE solution. So in this SASE solution, if you're going to achieve this SASE solution, there is a three main component of this SASE solution. Four main component. One is the SD-WAN, right? Plus SWG, Secure Web Gateway, SWG, GTNA, right? Plus आपका Firewall as a Service आप इसको बोल सकते हो. देखो यहाँ पे. So these are the आपके main component होते हैं. देखो Firewall as a Service, Secure Web Gateway, Zero Trust Network, and network access में आपका SD-WAN आ जाएगा, right? And you can see this is next generation. So if you want to become a SASE engineer, right? So this SASE engineer is nothing. You learn step by step firewalls. If you know the firewall, right? If you know the firewall, you know the SD. Just give me 1 second. If you know the SD-WAN, if you know the proxy that again SWG, Secure Web Gateway, and that you know about the Zero Trust Network concept, and you know how to configure, right? So if you know all these four, so firewall we are learning, SD-WAN we have to learn, and these two terms you might be getting the Prisma access or the if you're doing the Prisma access, or you might be doing like Cisco SASE, or might be the Versa SASE, or might be the Zscaler SASE, you'll get these two knowledge from there. So once you learn all four, means you are learning these all four, then you'll become the SASE engineer. Without these all four, you're not going to become a SASE engineer. So SASE is nothing. SASE is a concept. SASE is a concept, but it's combination of the multi technologies. Yes, I hope answer the question. Ravi, Ranvi, you got it? Yes, sir. Okay. तो सर SD-WAN करके मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं सर, इससे तो SASE कर लो. No, क्यों नहीं फायदा है? You are completed 2 steps ना, तो आपको आधा 50% SASE engineer तो बन गए ना आप. क्यों नहीं फायदा है? You think about it ना कि आपने SASE का कोई syllabus, SASE there is no SASE syllabus, कोई class नहीं होती SASE की special. आपको ऐसे ही करना पड़ता है. You just have to go step by step. Then you become SASE engineer. आपको SASE का concept पता होना चाहिए. Excuse me. Okay. Yes. Yeah. And remaining that another portfolio is there, right?
Cortex XDR and Data Lake, Cortex X. What is this portfolio regarding? Yeah, definitely. So the portfolio we are going to cover in our syllabus, that is a Strata PS series. This is the Strata PS series Palo Alto Firewalls. This we are going to cover in our entire module. So we understand about how the physical and the virtual firewall is going to be configured, how the panorama, what is the app ID, user ID, content ID, device ID. So this is our agenda for this particular class. This is the Prisma Access. This Prisma Access, which having the SASE solution, which we are discussing about, where secure access services, the firewall as a service, secure web gateway, zero trust, network access. We are going to talk about the cloud native security platform, right? We are going to talk about the SD-WAN. So if you want to become the SASE engineer, you just have to do the Prisma Access solution, where you have to learn each and everything. But this firewall is also mandatory. Without this firewall concept, you cannot learn this firewall as a service. So again, you are going to complete this concept all is going to leverage here. Yeah, So, yeah, understood. What is this one? Cortex XDR. What is this? coming. Just give me breathing space at least. yeah. So Sorry. Cortex XDR is a tool. This is the monitoring tool. So if you want to visualize how my network is behaving, how my endpoints are behaving, how my services are behaving, how my traffic is going through my network, and what the visibility in terms of threats, like what you see in the Palo Alto Firewall, we having one of the tab that is known as SEC Command Center, right? So it is giving the full visibility about this particular firewall, right? Yes, Similar in the Cortex XDR, having the wider visibility for the endpoint threat preventions, endpoint detections, उसको posture management करना, उसकी antivirus status का OS measure करना, उस endpoint से how the traffic and application traffic is communicating, उसकी latency क्या है, उसकी jitter क्या है, उसकी loss क्या है. So that all is going to be maintained or monitored by the Cortex XDR, and this is like just for the management, monitoring, and the troubleshooting purpose. This is the tool. There is no as such concept for the आपको यहाँ पे कुछ firewall configure करना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ operations के लिए relevant है. All Cortex XDR, Cortex XOR, and Expanse, everything is regarding for endpoint security. That means dashboard. These are the all single pane of the glass dashboard, which is the Cortex XDR. You'll get the all endpoint detection response here, extended security orchestration automation response. You want to do the security orchestration, उसको आपको automate करना है, उसकी automatic report चाहिए, threat intelligence management आपको करना है, पूरा deep analysis करना है, machine learning के साथ आपको attack surface को identify करना है. तो ये चार उसी के चार tabs हैं, उसी के चार टैब्स हैं, अलग अलग आपको साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज आपको इसमें मिल जाएगा, जिसको आप क्रिप्सिस बोलते हैं. एक्सपेंस में आपको अटैक सर्विस मैनेजमेंट, तो आपको इंटीग्रेटेड कनेक्टेड एसेट डिस्कवरी एंड मिटिगेशन प्लान आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कोई अगर आपका अटैक सर्विस कहीं से कोई वल्नरेबिलिटी अटैक होता है. Okay, so if you're getting anything from the internet and understood. Sorry. Yeah. Understood. And in this Cortex XDR, we are using Cortex Data Lake, right? Sorry? Cortex Data Lake. Yes. Yeah. Okay. We are integrated in Cortex Data Lake. That is external. Yeah. Okay. Right. Sir, So basically, you have to take that license for this only. You have to take this license. So everything you have to pay. Nothing is free. Then Palo Alto is Yeah. Yes. सर जो SD-WAN है, वो SD-WAN वर्सा अलग है सर? Yes. So SD-WAN having a different flavor. So we having a Cisco SD-WAN, and I'm the instructor of these two. Versa SD-WAN, right? We having the Palo Alto SD-WAN. Right, we having the Silver Peak SD-WAN, right? We having the Meraki SD-WAN, yes, right? We having the Velo Cloud SD-WAN, right? So we having a Carto SD-WAN. So बहुत सारे vendor है, बहुत सारे. अभी तो Viptela चल रहा है ना सर? So the hotcake is this and this. Okay. Three are the hotcake in the market. तो हम Cisco SD-WAN करेंगे ना सर? हाँ, Cisco SD-WAN. We'll do Cisco SD-WAN. Okay. Excuse me, sir. Yes, please go ahead. हाँ, मैं वरीद बोल रहा हूँ सर. Yes, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे पालो अल्टो हो गया या चेक पॉइंट हो गया, ATC, उसी तरह से क्लाउड सिक्योरिटी में कौन सा यूज करते हैं टेक्नोलॉजी सर?
So cloud security again, like आपके जो मैं बता था कि I have a two type of the firewall. One is the physical firewall, right? So physical firewall, and one is the logical firewall. या software based firewall इसको बोला था मैं, right? Software based firewall. So ये जो software based firewall, whatever we have, they can integrate in the cloud. So if you talk about the Azure cloud, आप AWS की बात करते हो तो Azure, AWS, आपका even GCP, Google Cloud, they all are using the Palo Alto software based firewalls. Palo Alto, तो आपको वहां भी यही फायरवॉल मिलेगा जैसे हम कर रहे हैं ना, सेम वहां मिलेगा, सब कुछ वहां मिलेगा, बस वो Azure के एक इंस्टेंस में जाके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो कुछ इनके इंटीग्रेटेड फायरवॉल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ Palo Alto ही मिलेगा, एवरी वेंडर सपोर्टिंग, लाइक चेक पॉइंट का मिल जाएगा, सिस्को का मिल जाएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में Palo Alto मिल जाएगा, या फिर Azure का अपना Azure फायरवॉल पे वो भी मिल सकता है आपको। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आता है ना सर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अलग है या फिर ये गूगल का अलग है या फिर उसके बाद अमेज़न का अलग है, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा जैसा आपने बताया। नहीं देखो, समझो बात को, अगर ये 3 वेंडर्स हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, ये तीनों ही Palo Alto को यूज कर सकते हैं या तीनों ही चेक पॉइंट को यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे मैं कस्टमर हूँ, राइट, मैं गया Amazon को बोला कि आई वांट टू टेक योर स्पेस फॉर माय नेटवर्किंग, राइट, सो मैंने स्पेस दिया, वो बोला कि आपको कौन सा फायरवॉल सर्विस लेना है, Palo Alto लेना है, चेक पॉइंट लेना है, Azure लेना है, या और वेंडर लेना है, तो मैं बोला कि नहीं मुझे Palo Alto चाहिए, तो Palo Alto लगा के दे देगा आपको। आपने बोला चेक पॉइंट दे देगा लगा के आपको, उसको क्या करना, उसको पैसे लेना है आपसे बस, राइट। ओके ओके ओके। तो सर जैसे हम ये मतलब जैसे नेटवर्किंग में हैं हम, तो अगर क्लाउड पे निकलना हो तो किस तरह, मतलब क्या, मतलब कैसे करना पड़ेगा? So again I'm saying, if you want to go in a cloud, right, so your networking concept should be very clear, right, your security concept should be very clear, क्योंकि वहां भी यही सारी चीजें होना, वहां भी आपको वर्चुअल स्विच मिलेगा, वर्चुअल राउटर मिलेगा, वर्चुअल फायरवॉल मिलेगी। So if you don't know about the networking security concept, then how you become the cloud engineer? Cloud में भी network engineer होते हैं, cloud network engineer होता है, राइट, आप लोगों ने देखा होगा, cloud security engineer होते हैं। So वो कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, they are the also engineer who is like us, right, they can know how to create the virtual switch in a cloud, they know how to create the virtual router in the cloud, they know how to create the virtual firewall and how to configure the virtual firewalls. The same concept is going to leverage in the cloud as well. ओके, क्योंकि कंपनियां इतनी इजीली लेती नहीं है ना क्लाउड को, जैसे हम नेटवर्किंग में अगर हम स्विच करें तो इजीली लेती नहीं है। So why वो नहीं आपको लेती है? Because there is a concept कि आप जब क्लाउड की बात करते हो तो इन क्लाउड आपको कुछ क्लाउड के बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। आपने Azure कभी पोर्टल पे लॉगिन किया है, आपने GCP पे लॉगिन किया है, आपने उसको टर्मिनोलॉजी को समझा है। जब तक देखो आपको कॉन्सेप्ट आना, टर्मिनोलॉजी आना, दोनों में फर्क होता है। जब उसको टर्मिनोलॉजी में आके जाके क्लाउड के बारे में पता चलेगा, उसके लोड बैलेंसेस कैसे काम करते हैं, उसके VNet क्या होता है, Azure नेटिव क्या होता है, अब ये सब चीजें आप जानोगे, देन यू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर हम नेटवर्किंग कैसे करते हैं, वर्चुअल स्विच कैसे बनाते हैं, देन यू विल गेट एन आइडिया। ओके, ठीक है। So I believe we are good for today, right? Okay. Sir, Pankaj sir, just one question. Yes. जैसे 8 PM पर ये क्लास स्टार्ट होगी, तो सर कोई और बैच है जो मॉर्निंग का हो? Priyanshu, sorry, morning का बैच नहीं है, so only evening batch is there, right? Okay, because actually I am working in like shifts. So like during my office I was watching this video like this session, so that's why it will be very active for me to join like classes on the daily basis during my office. So that's the thing, sir. Okay. No and problem. sir, No problem. Just ping your contact details. Someone will contact and will share some alternate option with you. Okay. Just I ping to you. Just share the contact details, so someone will contact to you. So definitely will guide how you can do that, even you don't have time. Okay. Okay, sir. Got it. Yeah. And sir, you are teaching like Zscaler also, right? Yeah. Right. Okay, sir. Okay. So, sir, like, is there a session like going on for Zscaler, or there will be So like new? Zscaler problem is like the lab cost is $1,200 for Zscaler, right? So for Zscaler,
one lab cost is a 1200, and you don't have to pay to us. If you want to learn Zscaler, you have to pay directly to Zscaler. So that is a Zscaler lab cost, and trainer cost is again going to be very high. So that is, I can say, like not bearable for the individuals. So that's why we prepared the video courses, and you can get every knowledge from there, because it is just one time expense for us, and we'll create that courses and you'll get everything from there. Oh, okay, got it. So yeah, yeah, Zscaler is in my infrastructure already. So if I just get those videos, so it will be useful for me. Like I can just you can go in our YouTube channel. You'll find a lot of videos which is prepared by me about the very basic. You'll not find any video other channels, but in our channel you'll find a lot of videos are there, and you'll learn basic fundamental of Zscaler free of cost. There is no charge. So we uploaded a lot of videos here for the Zscaler. You go there and you'll find. See, these are the Zscalers, SSMA, what is the IPsec, you'll find the Zscaler. See, this is traffic forwarding method. See, these are three back-to-back Zscaler, 4 classes, lagatar back-to-back Zscalers. So 8-9 classes we uploaded for the awareness. So Pankaj, I have just checked the 7 videos of Zscaler actually. So from this hello. YouTube channel, right? Yes, correct. So is there any membership for the no, the full course is only available in the offline. Full course only available in the offline. These are we just share some video for the awareness. People will come to know, yes, we are having the Zscaler training, so they at least understand the concept and visit to our channels, and at least they can connect to us. But full course is completely dedicated. That is a dedicated session you'll find, and all information you'll get from there. Okay. Okay. So thank you so much, everyone. Any other question last time? Anyone was? Anyone? सर आप मेराकी SD-WAN सिखाते नहीं? नहीं, मेराकी SD-WAN का भी हमारे पास लैब नहीं है. We just deal with Cisco and the Versa. 2 SD-WAN we are dealing right now. When will next class, sir? When will next class, sir? The next class will going to happen on a Tuesday, 1st of August. 1st of August. Okay, sir. Let me see. Monday को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. मुझे लगता है कि Monday को कर लेंगे और एक Wednesday को करेंगे हम next week. 2 क्लास तो करेंगे, या एक Friday को करेंगे. Monday, Wednesday and Friday 3 क्लास और 2 क्लास हम next week करेंगे ही करेंगे, right? This is the confirm. Okay. Okay. So you'll get information by Friday or Saturday कि कब क्लास है आपको, ठीक है ना? All right, so thank you so much for joining you all, and have a great evening. See you again in next class. Bye. Take care. Bye. All right, guys. Let's start our session. Okay. Let me share my screen. Okay, so I hope my screen is visible, right? Can anyone confirm? Yes. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much for confirmation. So once again, welcome you all in the GuiNet technology, and today our again live session, right? So we are going to have a discussion about the foundation of the firewalls, next generation firewalls. We'll try to understand what the all feature we having a next generation firewall और ये क्या-क्या कर सकती है, and how it is going to make our life easy in terms of the protecting our network infrastructures, right? Last class में we have done a discussion about the log security, कि क्या हमारा physical security होता है, क्या हमारा logical security होता है, that we have already done discussion, right? But still we are doing the foundation thing. So बहुत ही important है सारी चीजें. You should have very basic understanding to start your career in the Palo Alto Firewall or any other firewall, right? So before I start, I can see a lot of people are already joined. Anyone having any specific question to ask me before I can start the class? Anything? Then definitely we'll start the session. Or we are good to start. I can see a lot of people. Anyone having language problem? Anyone having like not able to understand Hindi, not able to understand English? Because it's a public session, so I want to respect everyone like emotions and the times. So just wanted to make sure like everyone understand everything. Okay.
So please feel free to ask if you feel any question, right? Raise your hand, put your question or query in chat, and we'll definitely happy to help you all, right? Because this is open session and we are very collaborative and very open-minded, right? And I'm very open to answer any query. It's related to might be networking, or firewalls हो सकता है, cyber security हो सकता है, SD-WANs हो सकता है. It could be anything. So always feel free, right, to ask. Thanks, Hemant, for the asking for the English. Definitely, we'll try to do Hindi and English both, and we'll try to understand each everything. Good evening, everyone. Sorry for being late. No problem, sir. Good evening. So let's start. Okay. So we done about discussion about the course, right? So what we are going to cover in this course, again, I'll just recap this, just few minutes, not I'm going to spend a lot of times on the course content and all, but still we are not started, like we are not going to start today and next class even the official like module for the Palo Alto. These we are covering the foundation of the firewalls, any firewall. Might be having a plan to learn the Cisco ASA Firewall, might be having a plan to learn about the Juniper Firewall, might be having a plan to learn about the any Checkpoint Firewall, FortiGate Firewall, you having the plan Palo Alto Firewall, XYZ, any firewall if you're having a plan to learn, right? You have to know basic concept of the firewall. Until you don't know why we are going to use the Palo Alto Firewall or any other firewall or basic firewall, probably you're not able to, understand the core concepts, how it is going to work, right? So foundation is very important. If you want to build a very good building, your foundation should be very strong. Then only building can be sustained for the longer period of time. So this is my motive. I want to spend much and more times to just build good foundations for all my professionals, colleagues, right? So हम एक अच्छी foundation यहाँ build करेंगे जिससे हम एक दूसरे की पूरी जो हमारी chronology है कि क्या हम करने वाले हैं, that we all are going to understand, right? So let's start without any further delay. We have done discussion about the what syllabus we are going to cover entire this session, right? In this particular module, that is a PCNSA and PCNSC. Also, we done discussion about the Gartner Magic Report. We discussed like why we should learn the Palo Alto Firewall and what are the leader available in the market, who leading the market in terms of the firewall services. So we having the Palo Alto Firewall, we having the FortiGate Firewall, we having the Checkpoint Firewalls. So these are the leaders in the market, and out of leader, the Palo Alto is leader in the market. Also, we have done discussion in the previous session, right? Who missed that particular session? Again, it's an overview session. So we'll provide the session recording. So you guys can, go through that. So you understand in deeper side, what module we are going to cover, right? So we having a 3 modules in the Palo Alto portfolio. That is a Strata series of the PS series firewall. That is a Palo Alto Prisma Access. I'm not going to cover what is a Prisma, what is a Strata, and the Cortex XDR. So these all products, and we are going to cover this Strata PS series firewalls because यही हमारा course का basically content है. Prisma Access अलग होता है, Cortex XDR भी हमारा अलग होता है. Anyone asking anything? Good evening, sir. Good evening, Walid. Good evening. How are you? Fine, sir. Good. Thanks for joining. Okay. So basically, lot of things we have to understand, but it is going to be very slowly, right? And gradually we understand each and everything. Then we compare a lot of factors in terms of the Checkpoint Firewall, in terms of the Palo Alto Firewall, in terms of the Cisco Firewall with the Palo Alto, FortiGate in the Palo Alto, and we understand why we should select the Palo Alto Firewall. Also, हमने बहुत सारे examples देखा था. I have given the very layman example like mobile phones, cars, like क्या क्या उसमें आप feature आप compare करते हो. किसी भी product को आप खरीदने जाते हो market में, तो what like you having in your mind before going to purchase. आप अपने pocket को देखते हो, how much money I have and the budget you have, that is actually the product you are looking for. Is it going to fit in your budget? If not, then what is the alternative product you have? Usme kya feature and how it is going to help and meet your requirement. So same thing is going to happen in terms of the any hardware or software based products. That is a firewall we are referring here. So आपके इसी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे maintain करना है, and that is going to cover each and everything in this way.
Also, we discussed why we need a firewall, right? But we'll continue from here. Why we need a firewall and firewall किस तरीके की, मैंने एक lemon example दिया था बहुत की, how the physical security and the logical security come in a picture. So physical security में किस तरीके से पूरी chronology बनती है कि आपके systems को, आपके infrastructures को कैसे you need a security design, like you having the security guards available in their offices, you having the access door controls, you having the ID cards, you having the asset management, you have to tag those assets. So अगर कोई लेके जाता है sensor आपके पास, उसको sense कर लेंगे and that is going to be protected. So वो सारी चीजें we have done a discussion, and also we discuss कि how the logical security come in a picture, right? कि हमारे पास internet है यहाँ पे, and then your router is connected with the internet, and this is your system, right? And when it want to access the internet, so you having another gate available here, exit gate, and another gate was here, which is the physical gate कि यहाँ से आप human entry कर रहे हैं, किसी भी तरह का मतलब exercise हो रहा है, that is a physical activity. But when the computer is going to in and out from the internet via your exit gateway, which is your router, then how your communication is going to be protected, right? So this we have done a discussion in very detail, and we come to know whenever we are going to out from our organization, we having a lot of type of devices. Might be you having a security devices, you having a routers, you having a switches, you having a printers, you having a servers, WLC, AP, XYZ devices, computer, whatever you have, they all need to be crossed with the channels. That channel is going to be scan you, and after scanning, it is going to provide some kind of result. Whether you should go out, that means you are allowed, or you should be blocked. That means you are going to be denied, right? So any action is going to be happen, either blocked, either allowed. So अगर आपके कंप्यूटर का जो इंटरनेट एक्सेस है, अगर आप उसकी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो आपको वो प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो वो आपको डिनाई कर देता है, राइट? सो दिस fundamentals we have done discussion. Now we are moving one step ahead from here, right? So कभी भी हम बात करते हैं, right? Any type of discussion if you are doing, right? Firewall and cyber security. We are keep discussing like firewall and cyber security, right? Firewall versus, if I am talking about the cyber security. So if someone is going to ask you, what is the difference between firewall and cyber security? Might be it's a very difficult question, or might be it's like a very easy question. It's totally depend how you having the understanding to answer these questions, right? So if I'm talking about the firewalls, so firewall, that is a simple definition. I would say anything, right? Anything, if you want to place in logical security for your network infrastructures, anything, I'm repeating the sentence, anything you want to place logical security. What is a logical security? Very important, guys. Logical security, right? One is a logical and one is a physical security. I discussed about this, right? Physical security. So if anything you want to place logical security to just protect your network infrastructures. So what are the network infrastructures? That could be your router, right? That could be your switch, that could be your servers, that might be your printers, right? Might be you having a WLC, might be you're having access point, might be you having the IoT devices, etc. A lot of devices could be there in your organization. So if you want to protect them, then you require the logical security, right? So how the logical security? Your firewall is going to provide the logical security. That means if your any device want to exit from your organizations, that is your router, because router तो चाहिए होगा ना आपको अपने बाहर निकलना है कंपनी से, तो router having those connection कि जहां से आपका internet connection is going to be terminated. So firewall भी हो सकता है, but just I'm giving the examples. This is the internet service provider. You can say like ISP, internet ISP, and you have taken the circuit from this ISP to this router, right? So let's say suppose this PC want to communicate with the internet. So this PC might be having one source IP address and one destination IP address. So this PC might be having this 192.168.10.10, and this is your source IP address, and this is your destination IP address. So destination could be anything. It is wanted to access the google.com. Sorry for that.
google.com. Is this Google should having any IP address like 45.4.2.2.4, any IP address is going to be happen. So once this packet is going to land, from this PC to this router doesn't having the, you know, security kind of the, you know, mechanism. They're having the very basic security. So still we can provide the logical security. We are talking about the logical security. This point we are talking. This router still can provide the logical security in terms of whenever the packet is going to be come on the router, we can apply the ACLs. These ACLs, right, access control list. This is going to check based on the source IP address, right, based on the destination IP address, based on the port numbers, right, or might be the protocols as well. But totally depend which type of ACL you are using. Again, ACL having a two flavors: standard ACLs versus extended ACLs. So if you are going to use extended ACL, you will get the more feature. If you are going to use the standard ACL, probably you will get the less features, right? So you have to be, you know, very good understanding about the ACL as well. So at least आप कुछ protection दे सकते हो. There is a high chance you can protect your network, but it is not like very capable device who can protect everything. They can provide the basic logical security, but not all the security whatever you're looking for. So if you want to place the security which is as per your intent, मतलब जो मैं चाहता हूँ, intent means intent based networking, intent based security. So that only going to possible by the using of the device that is known as the firewall, but not a simple firewall. We known as the next generation firewalls. So today we having a topic also, the next generation firewall understanding. So that's why I'm explaining. So next generation firewall is going to meet your all intent based security features, whatever you want to apply to just, you know, allow or deny the connections. Why? Because it's having the many criteria. These firewalls can do a lot of things. So I just define here, you having the one packet. And यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें दिख रही हैं, source IP address and destination IP address. This is the L3 packet we can say. ये हमारा जो packet है, ये हमारा L3 packet है. But ऐसा real production में नहीं होता है. It is not something you can say कि आपका ये real production में ऐसा होता है. It is never going to happen such way in the real productions. The packet which is originated from the PC, they having a lot of informations. That packet having a lot of informations. Let me just draw one of the packet types so you guys can understand at least. What are the all field we having in the packet? I'm just going to give you the idea so you guys can understand. So this is the one packet, right? And trust me, whatever I'm going to write it here, I'll going to prove in my labs while doing this session, okay? So if you draw this packet, so I'm just drawing some fields and let me fill it out. Okay, so let me just fill this information. So we should have the source MAC, right? We should have the destination MAC. We should have the source IP address. We should have the destination IP address. We having the source port, right? We having a destination port. We having the application ID, right? Just or let me just write from here. So app ID, right? In addition of that, we having the many more fields, which probably you are not going to understand, but I'm just writing it here. And in last, you having the payload. What is a payload? Actual content, actual data. So actual data, which you are just wanted to send. What could be the any Excel attachment, any email content you are writing in the email body. This is your actual content. और किसी तरीके का आप कोई PDF file भेज रहे हो, that could be the also possible. So it could be anything, right? It could be anything, whatever you want, it is going to be happen and it is going to be applied inside your packet. So that is your actual content, actual payload is going to be happen. So if I talk about this packet, this is known as the layer 2 information. This entire field is known as the layer 2 information. This field is known as the layer 3 information, right? This is known as the
layer 4 information. This is known as the layer 7 informations. This is actual your content. This is known as the content, right? Any attachment could be. And why I just mention here multiple field, it is going to relevant for you. So there could be the user ID. You don't know about what is the user ID, so I'm not going to explain. It might be you just having to use some kind of the device ID also, right? Device ID. Might be you're just going to use some URL also, right? So these are the different field are going to be even captured. So the next generation firewalls, they understand each and every sections. They are going to understand. They understand your MAC. They understand your IP. They understand your ports, that is source and destination. They understand your application. Any application could be the Facebook. Facebook use kar sakte ho, right? You might be going to use a Facebook, any WhatsApp. They understand. YouTube, all application is going to understand. Any device, कि आप कौन से डिवाइस से बात कर रहे हो, आप आईफोन से टॉक कर रहे हो, राइट? या आपके पास लेनोवो का डिवाइस है, या आपके पास डेल का डिवाइस है, कुछ भी डिवाइस, क्या ओएस है, दैट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाई. किस यूआरएल को आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर, नॉट एप्लीकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूआरएल. हो सकता है कि आप www.guinet.com से बात करना चाह रहे हो. This is again a URL. So you're talking about the guinet.com. That's the URL, right? And the next one is the actual payload, actual content. So every parameters, every communication, right? Yes, Khan is asking, can they understand the voice and video content? So definitely, see, voice and video content cannot be inspected because they are in form of the UDP packet. They are not going to be recognized because voice is just, calling. So they are not going to decrypt it. They are not going to be understand because they are the all UDP traffic. But whatever you are doing the TCP based traffic, they all are going to be understand. So we don't have the capability till now the next generation firewall to understand the voice and video content in terms of the while doing this streamings. Okay, so the any attachment, whatever you have, any URL, whatever you have, they're going to understand, and based on that, it is going to apply the policies. So how it is going to happen? So जब मैं यहाँ router लगाया था, so when the router was there, it having the limited kind of the feature. They understand the source and destination, port and protocol, only so 4 features they are understanding. And similar, our legacy firewall also having a similar kind of the steps. So we having a 2 kind of the firewall. One is the like old firewall, we can say legacy firewall, and one is a new firewall that is known as the next generation firewall. I'll discuss about the stateful and stateless inspection later on, probably in the next session. We'll discuss about this. Then I'll explain how they function, all the stateful firewall and stateless firewall, and see if possible we'll try to cover today as well. So that means if you having any kind of the firewall, right, old or new, so new having the much and more feature in compared to the old firewalls. They can provide lot of informations, they can inspect lot of information, and based on that inspection they are going to take an actions. So I mean to say, when the packet, same packet is going to land again, and you having the logical security apply here, and this time you having a device as a firewall, so this firewall is going to check each and every parameters which packet is going to come via this PC to this particular interface. So once the packet is going to land, because the firewall is now before your internet router, so firewall is going to check, hey, are you coming with this particular MAC address? Are you allowed to go on the internet? If you answer is yes, I'm allowed, then you can go. It is going to check next, this IP is allowed or not. So that IP is allowed. This particular application you are trying to access, is it really allow you from your company? You can access the Facebook or WhatsApp. If answer is yes, then it is going to process that. If no, then it is going to be dropped right away from here. So anything which is going to be processed via the firewall, the inspection is going to happen. Full inspection is going to happen of this particular packet, and based on the inspection, whether the packet is going to be out or simply they are going to be dropped. Similar, what URL you are accessing. Might be the data you are sending or uploading on the internet or downloading from the internet.
they having any sensitive information, might be they having the malware, they having the virus, they having a content, anything which is like you are leaking from your company, so data leak. So those steps also going to be throughout checks from the firewall, and firewall is going to be make sure none of the compliance from your company point of view should cross without your permissions. So everything, any packet, even if whatever you're doing in the browser, that is also going to be monitored. Nowadays, technology is changing very fast. You having the browser control features available, not in the firewall, but most of the proxy-based solutions. So even whatever the activity you are doing in the browser, in HTTP header, HTTP cookies, everything is going to be inspected, and based on the inspection, they are taking the action in different ways. So you can save your network precisely whatever you want. You want my employees should not access Facebook during my business hour, you can block the Facebook. You want my employees should know any not access any dating website, you can block all dating website. You want to block all games website, you can block all the games website. So all possible, just you need to put your right intent. If you are putting your right intent, that all is going to be possible. Okay, so your next generation firewall, when you place your next generation firewall, it is going to provide logical security, and while providing a logical security, it is going to completely inspect everything, whatever you're doing communication from in to out. And similar way, when the reply is going to come from the internet, okay, when you send any packet and your internet based server is going to reply to you. So before this reply reaches to you on this particular PC, this firewall again check this reply. It does not mean you are sending something, then only firewall is checking. No, your flow is going out once it has been checked. But when the flow is get reply from the internet, it is again going to be checked. What kind of attachment you are downloading from the internet? Is there any kind of the virus, any kind of trojans, any kind of like sensitive information, vulnerability, anywhere in the spying activity? So those steps is also going to be checked, and after checking those steps, whether if the firewall is found you are applicable to go inside, then it is allowed, else it is simply going to be drop you. So in and out, complete policy is going to be checked. This is the beauty of the next generation firewall, right? So I hope you guys having the basic understanding what is the basic function of the firewalls. Anything you want to protect from your logical security point of view for your networks, that firewall is basically going to help you out, right? Now the question is coming here. Meanwhile, guys, any question till now here? Anyone having? Because I spoke around 21 to 23 minutes. Any question anyone having? पूछ सकते हो आप लोग, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पूछ सकते हो. I don't have any issue. I can see almost 27 people are here. So if you're having any question, then it's fine. No, then we can move ahead. We can move ahead. Thank you. Thank you so much. So now let's move on the cyber security. So firewall, we understand what is a firewall, what is the functionality, how it is going to help you out. Now cyber security, if you discuss about the cyber security, it's a very broader, like I can say, word. It's not a very small thing. Cyber security having the very broader pictures. But can I go in the cyber security if I don't have the firewalls? Can I go in the cyber security if I don't have the firewall skill? If I don't have the networking skills? The two component we have here. Understand clearly, guys. So network. Hello, namaste, sir. Namaste, very namaste. Is this I'm asking about question, sir. Is it suitable? मतलब जैसे राउटिंग एंड स्विचिंग है तो उससे इजीली मूव होना आसान रहेगा सर सिक्योरिटी में? That's a very good question. So I will definitely come on this. So आपका question बहुत अच्छा है, and let me just answer your question as well. So वही मैं बताने, और इसके अलावा कोई question आपका, or is it only question कि routing switching से? Sir, actually is routing and switching is a hard line and मतलब it's हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में पूछो, कोई दिक्कत नहीं. I can understand you are trying very best. हाँ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं. मेरे कहने का मतलब है सर ये थोड़ा हार्ड लाइन है राउटिंग एंड स्विचिंग,
और इसमें एक्चुअली जो सिक्योरिटी है, मतलब जितना भी अब तक चल रहा है आजकल, लोग सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, वैकेंसीज भी ज़्यादा ही हैं। तो ऐसा क्या हम करें जिससे हम सिक्योरिटी के अंदर हम अच्छा बेनिफिट्स और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें? ओके, थैंक यू सार्थक फॉर आस्किंग। पहली बात कि नेटवर्किंग हुआ एंड सिक्योरिटी हुआ, राइट, दोनों ही हार्ड नहीं है, बहुत इजी है सीखने के लिए। पहली बात, अपने माइंड में एक एक्सेप्टेंस लाओ कि बोथ आर वेरी इजी एंड आई कैन डू। देयर इज नो चांस यू कैन से कि बहुत हार्ड मैं सीख नहीं सकता। नो, आपको ये बोलना आई कैन डू और मैं इसको सीख सकता हूँ। देयर इज नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड। पहली बात, कोडिंग आपको नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए। अलजेब्रा आपने जो बनाया है इसमें फिजिक्स के जो फॉर्मूला होते हैं, अलजेब्रा जो होते हैं, मैथमेटिक्स के और केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला होते हैं, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दीज आर समथिंग कि आप अपनी जो जिंदगी में डेली यूज करते हो ना चीजों को, वही चीज आपको पढ़ना है। आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हो, जस्ट थिंक अबाउट कि मेरे मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चलता है, कैसे मैं यूट्यूब चलाता हूँ। यू ट्राई टू फिगर आउट दोज आंसर्स। एंड मेरे मोबाइल पे कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो दूसरा क्यों नहीं उसको हैक कर पाता है? यू हैव टू फाइंड दोज आंसर। मेरी ईमेल्स को कोई दूसरा हैक क्यों नहीं कर पाता? जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चलता है, यू विल लर्न द नेटवर्किंग कंपोनेंट। जैसे आपको पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल पे जो मैसेजेस आते हैं दूसरा कोई हैक नहीं कर पाता है, तो आपको वहां पे सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो इट्स सर, जहां तक मुझे भी लगता है कि आई एम सो सॉरी डिस्टर्ब, बीच में टोक रहा हूँ, राउटिंग एंड स्विचिंग इज द बेस ऑफ फायरवॉल एंड सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आपको राउटिंग स्विचिंग नहीं आती तो आप फायरवॉल में और सिक्योरिटी में हमेशा आगे अटकोगे। हाँ, एग्जैक्टली। सो जो मुझे लगता है बिल्कुल 100% सही है, यू आर 100% राइट। सो इसलिए मैं आ रहा था साइबर सिक्योरिटी पे। तो मैं यही इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या मेरे पास साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए क्या मेरे को फायरवॉल आना चाहिए, क्या मुझे नेटवर्किंग आना चाहिए, सिक्योरिटी कंपोनेंट। सो द बेस और द लाइक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बोलूं, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, राइट, तो देयर इज अ मैंडेटरी थिंग्स यू शुड नो। आपको नेटवर्किंग भी आनी चाहिए और आपको सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। तो नेटवर्किंग की मैं बात करता हूं तो बेसिक नेटवर्किंग एटलीस्ट आपको सीसीएनए लेवल का नॉलेज आना चाहिए। अलोंग विद दैट कोई भी एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन यू कैन मूव योरसेल्फ इन साइबर सिक्योरिटी। दिस इज द ब्रॉडर थिंग आई एम टेलिंग। इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई एम टेलिंग कि अगर सच में अपने आप को साइबर सिक्योरिटी में ले जाना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको नेटवर्किंग तो आनी चाहिए। इवन यू आर गोइंग इन द फायरवॉल, स्टिल आई एम रिकमेंडिंग एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपको कोई भी फायरवॉल सीखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीसीएनए जरूर करो। क्योंकि फायरवॉल के अंदर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द राउटिंग्स। मैं सारा करके दिखाऊंगा कोर्स करने। इसके अंदर आपको वीलेंस समझना है, आपको इसके अंदर ओएसपीएफ चलाना है, आपको इसके अंदर बीजीपी चलाना है, आपके इसके अंदर स्टैटिक राउट चलाना है। सो अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं आती, सॉरी ओएसपीएफ को मैं गलत लिख दिया, ओएसपीएफ। सो अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती है एंड यू आर द फायरवॉल इंजीनियर, राइट, यू आर द फायरवॉल इंजीनियर, so how basically you are going to do all this stuff? Because these are the part of my syllabus. मैं ये सारी चीजें कराता हूँ, राउटिंग कराता हूँ, वीलन कराता हूँ, ओएसपीएफ कराता हूँ, बीजीपी कराता हूँ। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं बताता हूँ, बट हाउ द फायरवॉल ऑन द पालो अल्टो फायरवॉल, आपका बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीलेंस कैसे, इंटरवीलेन राउटिंग कैसे होती है, दिस ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो सार्थक, कमिंग टू यू, you are coming from the network background, you met one criteria already, you have CCNA knowledge, that means you are eligible to start your career with the Palo Alto Firewall or any other firewall vendor. और एक चीज बताता हूँ आपको, कोई भी फायरवॉल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है तो यू कैन इजिली लर्न एनी ऑफ द फायरवॉल, इजिली लर्न। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि Palo Alto मुझे या कोई अदर फायरवॉल करना है तो मेरे लिए कुछ फायरवॉल का कोई कोर्स होता है। देयर इज नो कोर्स। आप अपना बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर रखो एंड देन यू कैन स्टार्ट एनी फायरवॉल। आपको चेक पॉइंट करना हो कर लो, आपको FortiGate करना वो कर लो, आपको LTM पढ़ना वो पढ़ लो। LTM इज लोड बैलेंसर, नॉट अ फायरवॉल, बट आप कर सकते हो। आपको कोई क्लाउड फायरवॉल पढ़ना हो उसको पढ़ लो। You can do anything, but you should having the basic fundamental knowledge in networking and the security. अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो, so if you wanted to become a cyber security engineer, then you just have to these all fundamentals very clear. अब हम बात करते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी का जो जॉब्स होता है, राइट, साइबर सिक्योरिटी का जो जॉब्स होता है, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन्स।
सो यू गैस कैन अंडरस्टैंड नाउ। सो अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं हम, तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो इसकी जो हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारा डोमेन होता है साइबर सिक्योरिटी का, और एक्चुअल हमारे पास, अगेन लेट मी जस्ट पुट इट हियर द फायरवॉल, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जेन फायरवॉल, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है साइबर सिक्योरिटी वर्सेस नेक्स्ट जेन फायरवॉल, तो देखो बहुत सारे सिमिलरिटीज दोनों प्रोफाइल में होती है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होते हो, वहां पर भी आपको फायरवॉल को ही यूज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी इज वन डोमेन, बट फायरवॉल इज वन प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू यूज इन दैट डोमेन। Cyber security is one domain. Networking routers, which is the part of the product which is going to use in the cyber security domain. Cyber security is a one domain. Inside of cyber security, a server might be going to be used. Your any kind of the firewalls, routers, switch, they all are the part of cyber security, because cyber security is a broader word. Inside of a cyber security, we having the all networking security component which needs to be protected in terms of the any kind of the threats, any kind of the malware activity, any kind of the ransomware attack, any kind of the spyware attack, right? So हमारे पास any kind of the botnet attack हमारे पास हो गया, हमारे पास किसी का ट्रोजन का अटैक हो गया, किसी तरह का वायरस का अटैक हो गया, किसी तरह का DDoS जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं किसी डिवाइस पे, किसी नेटवर्किंग डिवाइस पे, आई वांट टू प्रोटेक्ट देम, सो आई नीड अ firewalls. I need a cyber security solution should be placed inside of my organization. वो solution कहाँ से आएगा? हवा में तो आएगा नहीं। You need a device, you need a product, वो आपको firewalls provide करती है, वो आपको proxy provide करता है. So these are the cyber security. Cyber security basically the broader work inside of security. हमारे पास बहुत type के engineers होते हैं, network के भी होते हैं, आपके firewalls के होते हैं. They all work together and they having a responsibility to secure your organization for any kind of the attack. So मैं थोड़ा सा आप लोगों को इधर अपनी स्लाइड पे ले आता हूँ. Let me just move on my slide so you guys can understand. देखो, so जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है कि आपके पास साइबर अटैक्स होते हैं, राइट? साइबर अटैक्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं. तो साइबर अटैक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? Who is going to protect? So आपके मोस्ट कॉमन जो दो सॉल्यूशंस हैं टू प्रोटेक्ट द साइबर सिक्योरिटी, एक होता है आपका प्रॉक्सी, और दूसरा आप यूज कर सकते हो नॉट फायरवॉल, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के दिमाग में रखना बात को. फायरवॉल इज लाइक लेगेसी वन. सो प्रॉक्सी सॉल्यूशन यूज कर सकते हो या आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सॉल्यूशन यूज कर सकते हो. व्हेनेवर यू गोइंग फॉर द प्रॉक्सी सॉल्यूशन, हमारे पास क्या प्रॉक्सी के मेन वेंडर क्या हमारे पास है? प्रॉक्सी सॉल्यूशन के आज के डेट में हमारे पास जो मेन वेंडर्स हमारे पास हैं, दैट इज Zscaler इज लीडिंग इन द मार्केट, दैट इज GIA सॉल्यूशन, राइट? ये हमारे पास सबसे लीडिंग मार्केट है. दूसरा हमारे पास प्रिज्मा एक्सेस है, जो हमारे पास किसका, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द Palo Alto. सो यू कैन थिंक अबाउट सिस्को के पास भी ऐसा नहीं है, सिस्को का भी अपना है बहुत सॉल्यूशन, सिक्योरिटी का सॉल्यूशन, उसको भी यूज कर सकते हैं. बाकी अब अभी हमारा नेट स्पोक भी आ गया है, और भी वेंडर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, बट दीज आर द क्वाइट पॉपुलर एंड ट्रस्ट मी, Zscaler इज लाइक लीडिंग इन द मार्केट. कोई भी इसके आसपास नहीं है, इवन Palo Alto भी नहीं है इसके आसपास. सो दीज आर द प्रॉक्सी सॉल्यूशन. इनका काम होता है कि योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ द थ्रेट्स, any kind of cyber attacks, any kind of the like I can say कुछ भी, कोई ransomware होता है, spyware होता है, सब तरीके से आपको उसको प्रोटेक्ट करना. सेम चीज फायरवॉल इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइड द सॉल्यूशन. अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, वो भी आपको ऐसे ही प्रोवाइड करती है. तो अब बात आती है कि सर मैं प्रॉक्सी किस सॉल्यूशन में यूज करूं और किस केस में फायरवॉल यूज करूं, राइट? तो बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम प्रॉक्सी कब यूज करें, फायरवॉल कब यूज करें. तो देखो, ये डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप द नेचर ऑफ ट्रैफिक यू वांट टू यूज. सो आज के डेट में अगर Zscaler की बात करूं, तो अर्लियर व्हेन Zscaler वाज डिजाइन, सो ये सिर्फ आपका वेब ट्रैफिक सपोर्ट करता था. वेब ट्रैफिक मतलब क्या? आपका वेब ट्रैफिक होता है HTTP और HTTPS, मतलब जो ब्राउजर बेस आप जो भी कोई URL एक्सेस करते हो, दोस ट्रैफिक इज ओनली गोइंग टू सपोर्टेड बाय Zscaler अर्लियर, जिसको हम एक हमारे पास टर्म होता था टनल 1.0 सॉल्यूशन, जिसको डिफाइन किया था. बट नाउ जो Zscaler सॉल्यूशन है, इक्विवेलेंट टू द फायरवॉल्स, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल उठा लो, आप Zscaler सॉल्यूशन ले लो, इट्स लाइक द जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आपको देता है. तो मगर अगर आपको फायरवॉल नहीं डिप्लॉय करना, मत लो. आप डोंट हैव द एनी रिक्वायरमेंट, यू यूज अ
Zscaler solution which having the firewalls plus proxy both, and additionally they can going to understand HTTP plus HTTPS plus any other ports and protocol traffics. So ये पहले नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, इन्होंने दूसरा टनल बनाया, टनल 2.0. इसके अंदर they are going to provide the full view, right? You can do the HTTP, you can do the HTTPS, you can do like any port protocol based communication. And now if you're taking the single solution from Zscaler, trust me, no need any firewall. आप कहीं से भी काम कर रहे हो, you're working from the anywhere in the world, आप एरोप्लेन से वर्क कर रहे हो, आप किसी कैफे में बैठ के काम कर रहे हो, आप किसी बीच पे बैठ के काम कर रहे हो, आप किसी हॉलिडे स्टेशन पे गए वहां से काम कर रहे हो, आप ऑफिस से काम कर रहे हो, you are going to get similar kind of the security policy while accessing all the your company applications, all the cloud-based application, all the data center-based hosted applications, or all any web applications. किसी भी तरीके का आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, then you are going to get solution like that कि आपको कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So the Zscaler having the market cap is a very large right now, right? Trust me, इतनी ज्यादा उसकी market cap हो गई कि पूरा security domain को लगभग उसने suppress कर दिया है in terms of the proxy और plus अपना advanced firewall solution की वजह से. But still, Palo Alto is again having this feature. So इसकी भी कुछ limitations हैं कि you cannot send like netted traffic directly from their local breakout to any destination. अगर आप proxy यूज करते हो तो there is a limitations कि आपको साइट के जितने भी ट्रैफिक है, you just have to send all the Zscaler first and then Zscaler will make a connection on behalf of you. So proxy का ही solution होता है कि आप पहले proxy को दो, proxy आपके behalf पे, proxy का मतलब यही होता है कि आपके behalf पे कोई communicate करता है, right? So this is how proxy is going to work. But if you want to go locally, then it is not possible via the proxy solutions. Then you require the firewalls. So firewall में क्या होता है कि आपको अगर locally किसी destination में जाना है तो यहाँ पे या यहाँ से NAT होकर आपके destination पे चला गया and you access the internet. So this is how it is going to work in the firewall solution. And same thing, like you want to inspect any kind of traffic, like it based on the layer 7, layer 3, layer 4, port protocols, URL, applications, content, everything is going to be protected within the firewall. So if I say proxy plus firewall nowadays are going to provide a similar kind of a security, even I'm talking about the next generation firewall. Additionally, proxy having some kind of the advantage कि वहां पे आपको जितने भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है, कैश भी सॉल्यूशन वहां पे यूज होता है, इनलाइन डेटा आपको वहां मॉनिटरिंग हो जाती है, कोई भी SaaS एप्लीकेशन आप यूज करते हो, still they are going to provide everything like in terms of the very good holistic kind of security parameters जहां पे आपका सारा कुछ protected होता है. Firewall भी same चीज कर सकती है when you are going to use in conjunction of the SD-WAN solutions. So it's totally depend how your organization is going to adopt the solutions. But दोनों ही केस में you can achieve everything. So अगर आप cyber security यूज कर रहे हो तो you just have to depend on these two products, right? Either proxy, either firewall or both. Many company use both. क्योंकि उनका कुछ कुछ अपना रिक्वायरमेंट होता है. Then you are going to protect your organization with all cyber attacks. और ये अटैक क्या क्या हो सकते हैं? Just viewer, phishing एक अटैक होता है, एक मालवेयर होता है, ये भी एक अटैक होता है, एक रैंसमवेयर होता है, आपने सुना होगा, ये भी अटैक होता है, एक स्पाईवेयर होता है, ये भी अटैक होता है. तो एक एक चीज थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं. फिशिंग क्या करता है? फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब ये होता है कि by use of the phishing attack, they just going to try to get your informations, right? कि जैसे आपका कोई यूजर नेम कोई मेरे को चाहिए, आपका ईमेल आईडी का यूजर नेम क्या है, I just want to get your passwords, your credit card details. मेरे को उससे कुछ fraudulent activity करना है, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड से पैसे मतलब चुराने हैं, या आई कैन से पासवर्ड से आप ईमेल मुझे कुछ हैक करना है. सो दिस इज द फिशिंग. उसमें होता क्या है कि कुछ आपको अटैचमेंट आते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो, और जैसे आप लोग कई बार देखा होगा कि यू वॉन द लॉटरी ऑफ दिस मच अमाउंट, आप कई बार ऐसा मैसेज आता है. एंड इवन trust me, one time what happened with me, I was traveling in somewhere in the train, okay, and I got suddenly message ki your credit card rewards point is 5000 and available, you need to just redeem it. मैं सोचा यार मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड है and then I want to redeem it,
सो मैंने उस पर क्लिक कर दिया एंड आई वाज इन डिफरेंट माइंडसेट। मैंने मेरे सामने एक फॉर्म खुल गया ट्रस्ट में, और उस फॉर्म के अंदर उसने पहले पूछा कि व्हाट इज योर क्रेडिट कार्ड, मैंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया। फिर पूछा कि नहीं पहले नाम पूछा, नेम मैंने डाल दिया। देन इट वाज लाइक व्हाट इज योर क्रेडिट कार्ड नंबर, मैंने वो डाल दिया। देन अगेन आस्क व्हाट इज योर सीवी नंबर, मैंने वो भी डाल दिया। एक्सपायरी डेट मैंने वो भी डाल दिया। मैंने मोबाइल पूछा, वो भी डाल दिया। उसके पूछा कि आपका ओटीपी आया होगा, वो डाल दो, मैंने वो भी डाल दिया। And then when I put the OTP and then I realized I make blunder. Trust me, I make a blunder. And I was in travel and I was like मैं पूरे मेरे body sweat होने लगी कि because the credit card having the good limit and I just put it everything and then I realized I did like something which is not good for me. ट्रेन में नेटवर्क भी नहीं था एंड आई सडनली आस्किंग द मोबाइल्स फॉर समवन कि भाई दे दो कैसे कैसे, और मैं जैसे जैसे कस्टमर केयर को फोन मिला एंड आई इमीडिएटली ब्लॉक माय कार्ड, भाई इसको अभी ब्लॉक करो। सो वो कभी कभी माइंडसेट ऐसा होता है कि आदमी थोड़े से मतलब पीपल आर वेरी क्रेजी, कुछ आपको फ्री मिलता है कि चलो रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल गए, 5,000 के मैं शॉपिंग कर लूंगा या कुछ बर्गर पिज्जा खा लूंगा, काइंड ऑफ स्टफ। सो पीपल who doing this phishing activity actually they trying to attempt something by using them like they get some information from you. So आप लोग ऐसी चीजों से बहुत बच के रहना है, राइट। सो दिस इज अ वेरी कॉमन, कई बार आप लोग ईमेल भी आता होगा, राइट। सो इस तरीके की चीजें आपकी होती रहती हैं, राइट। दूसरा हमारे पास जो होता है that is a malware. So when I talk about the malware, malicious software, it is going to install in your systems, right? आप कुछ फाइल डाउनलोड करते हो, उसके अंदर मालवेयर होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हो कुकीज के फॉर्म में, एड ऑन के फॉर्म में, दे आर गोइंग टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। एंड जब वो सिस्टम में आपका इंस्टॉल हो जाता है, राइट, सो दे आर जस्ट गोइंग टू योर स्प्रेड दैट मालवेयर इन अक्रॉस योर लैन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और उसकी वजह से आपका पूरा डेटा जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, आपका नेटवर्क पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगेन यू आर लूजिंग योर business, you're losing your data. This is ransomware attack होता है, राइट। अब ransomware attack क्या करता है, ये क्या करता है कि सपोज मेरा एक कंप्यूटर है एंड इफ आई गेट द ransomware attack, किसी तरीके से दे पुट सम malware in software my PC और उसके अंदर उन्होंने ransomware attack डाल दिया, so they are basically encrypt the data which is hosted in my computer. Ransomware, whenever a ransomware attack is going to happen, they basically encrypt the data which is going to available in my system. आपके सर्वर में कोई डेटा हो सकता है, राइट। आपके कोई ड्राइव हो सकता है, जैसे मेरी ड्राइव है, मान के चलो कि आई एम गिविंग द ट्रेनिंग्स एंड आई एम जस्ट हैविंग दिस डी ड्राइव, लॉट ऑफ मटेरियल आई हैव, राइट, और इस फोल्डर को किसी ने इनक्रिप्ट कर दिया। अब मेरे पास तो बहुत क्रूशियल डेटा है, मेरे पास पूरी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हैं, मेरे ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, मैंने कितने सालों की मेहनत किया है, राइट, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं। सो अगर ये किसी तरीके से रैंसमवेयर अटैक हुआ, दे लॉक माय फोल्डर, दे एन्क्रिप्ट माय डेटा, मैं उसको खोलूंगा, खुलेगा ही नहीं। सो अब क्या होगा, दे आस्क मनी कि आप मुझे दोगे पैसे तब मैं आपको ये दूंगा, राइट। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, देखो जो भी अटैक होते हैं ना, रुको मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके कुछ मोटिवेशंस होते हैं। आई विल कम द पॉइंट अगेन, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ आप लोग को बताने के लिए। सो मैं आप लोग एसडीवन की ट्रेनिंग में ले चलता हूँ। सो लेट मी जस्ट गो देयर वेयर आई वाज, SD-WAN security, no this one. So कोई भी हमारा अटैक होता है ना, थ्रेट लैंडस्केप, इसके कुछ रीजन्स होते हैं, राइट। रीजन्स क्या हो सकते हैं कि जैसे अभी नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में हमारा वॉर चल रहा है। देयर इज टू काइंड ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन। वन इज अ फिजिकल वॉर, जिसमें एयरप्लेन को किल कर रहे हैं या फिर वो अपने बॉम्ब्स को एक दूसरे पे सिटी पे गिरा रहे हैं, दैट इज अ वन वे ऑफ द डिस्ट्रॉइंग द कंट्री, उससे भी उनका नुकसान हो रहा है। अनदर वॉर इज गोइंग ऑन इज साइबर वॉर। साइबर वॉर से क्या हुआ कि उनके बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने हैक कर लिया, लो जी सारे पैसे तुम्हारे गायब कर दिए। अब तुम ऐसी जब कोई किसी का पैसा ही कोई ले लेगा तो यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग। आपका मैं पूरा डेटा ही, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एम्स, दैट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया, वी कैन से दैट, राइट, हेल्थ, उसके पूरे डेटा हैक हो गए थे, पूरा सर्वर, पूरा डेटाबेस, सब कुछ पूरा हैक हो गया। इवन मतलब रिसेंटली न्यूज में तो नहीं आया, बट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली वी नो दैट
कि अभी तक वो रिकवर नहीं हुए हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस। कुछ कुछ उन्होंने जुगाड़ से रिकवर किया है, बट नॉट एवरीथिंग। सो नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड भी साइबर क्राइम हमारे पास होते हैं। साइबर वॉरफेयर होता है, जैसे कंट्री के बीच में हम चलता है कि इनको डिस्ट्रॉय करना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी होता है, टारगेटेड अटैक। जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आई एम इन द मॉल and there is 2 hypermarket, right? Just think about, one is the D-Mart and another is might be having the Reliance one. Just what a big bazaar we can, it's closed, but just think about the big bazaar. There are 2 I can say the big bazaar and the D-Mart, we can say hypermart is available in the mall. So मेरे को आया कि मैं कुछ क्राइम करूं, क्या क्राइम का रीजन हो सकता है? अब ये 2 हैं। अब बिग बाजार को लगता है कि डी मार्ट में बहुत ज्यादा लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए और मेरा ना कस्टमर बेस थोड़ा सा कम है एंड आई एम लूजिंग माय बिजनेस। दोनों ने इक्वली इन्वेस्टमेंट कर रखा सा, 100 करोड़ रुपीस इन्हें लगा रखा पूरा एक अपना सेटअप करने, बट ही इज सेलिंग लॉट ऑफ लाइक, बिकॉज इसका कस्टमर बेस, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट जो भी बहुत अच्छा है, बट बिग बाजार को लगता है कि आई वांट टू डिस्ट्रॉय डी मार्ट। सो इट कुड बी go anything, like it can contact with the cyber criminals. वो कॉन्टेक्ट करेगा साइबर क्रिमिनल से, उनको बोलेगा कि लो तुमको मैं दिया 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, जो भी ऑफर करना चाहे, 1 मिलियन, 2 मिलियन। और इसके जो नेटवर्किंग सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, इसको डिस्ट्रॉय कर दो आप। सो द मोमेंट इट इज गोइंग टू बी हैपन, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टारगेटेड अटैक, कि इसके पास 100 कस्टमर क्यू में लगे हुए हैं, 100 customers are in the queue for the grocery billing purchase, right? और इसके पास 5 हैं अभी, right? 5 हैं, but they are in the 100 queue, but suddenly इसकी बिलिंग बंद हो गई। There is no billing happening because आपका पूरा सिस्टम हैक हो गया। अब जब बिलिंग बंद हो गया तो ये कस्टमर जो अपने घर से आया मॉल के अंदर, इसको किसी को माइट बी राइस, समवन नीड टू परचेज, किसी को वेजिटेबल खरीदना है, किसी को अदर ग्रोसरी, दे स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर 30 मिनट एंड 1 hour. So they gradually shift their customer base from here, and once the customer will come here, his sale is going to be increased. तो इसका सेल बढ़ गया, तो इट्स गेटिंग अ बेनिफिट, राइट? उसने पैसा दिया उसको 1 लाख रुपीज, बट इट इज गेटिंग अ मोर एंड मोर बेनिफिट्स, राइट? कि उसको क्या वहां पे मिल रहा है। सो इस तरीके से बेसिकली आपके ऑर्गेनाइज जो क्राइम होते हैं, टारगेटेड अटैक होते हैं, वो आपको बेसिकली इस तरह के देखने को मिलते हैं, राइट? सो एक मिनट, लेट मी सी हु इज टॉकिंग। ओके, सो ये आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी हो सकते हैं। रैंसमवेयर, दिस इज अगेन जो इनक्रिप्ट करता है, फाइनेंशियली मोटिवेटेड, ये इसके अंदर भी आ सकता है। या मैं किसी से पर्सनली आई वांट टू जस्ट, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी है एंड आई वांट टू जस्ट डिस्ट्रॉय योर मनी, और मुझसे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं आपको मतलब आपको या तो किसी को पैसे देकर या मैं खुद ही आप पे अटैक करके, या मतलब उससे मेरा कुछ बेनिफिट हो, तो ये सारे रीजन होते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। सो दीज आर द लैंडस्केप्स, जो थ्रेट्स के रीजन होते हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसके कारण की जो रीजन होता है, हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। दीज कुड बी द रीजंस, राइट? और कुछ पॉपुलर आपके पास जो अटैक्स हुए हैं आज तक, जैसे डिनायल ऑफ सर्विसेज हुआ, राइट? रैंसमवेयर हुआ, मालवेयर हुआ, आईकी वर्जन जैसे आईपी-सेक का हुआ, याहू डेटा ब्रीच हुआ। दीज आर द पॉपुलर स्टफ बिकॉज ऑफ द आपका साइबर सिक्योरिटी का जो आपका मतलब मेथड था, दैट वाज द वीक। सो कमिंग टू द स्लाइड अगेन, सो इसी तरीके से ransomware that is going to encrypt your all data, and after doing the encryption it is going to destroy each and everything. So this is a cyber security kind of the ransomware जो आपका बहुत कॉमन, तो अगेन ये साइबर अटैक के अंदर आता है। स्पाईवेयर क्या होता है? बस स्पाईवेयर का काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ताक झांक करना, राइट? इट्स गोइंग टू डू अ स्पाइंग एक्टिविटी, कि कुछ फाइल आपका, एंड द थिंग्स व्हाटएवर आई एम टॉकिंग, right? I'm going to proof in my labs also. See, these are the part of my labs. So it's not like theory. अभी आप इसको theory समझो. Again, we'll recap it here. सारी चीजें हम यहाँ पे लैब में करेंगे, and I'll proof each and everything how it is going to protect with the Palo Alto Firewall. See, so just for the reminder कि हम आगे सारी चीजें हम लैब्स में करेंगे, but I'm just giving the overview कि आप लोग एक fundamentals पता होना चाहिए कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं और किस तरह के अटैक्स होते हैं, and how we should be very cautious to अपने आप को कैसे अलर्टनेस रखना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हमें सेफ रखना चाहिए। क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी बनने जा रहे हो, क्योंकि आप फायरवॉल सीखोगे तो यू विल बिकम द फायरवॉल इंजीनियर, ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी आप बन जाओगे बाय डिफॉल्ट। आपके पास एक डिग्री आ जाएगी कि आप साइबर सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जैसे फायरवॉल सीखोगे वैसे ही।
So you should know, you should be very precise. अगर कोई पूछता है कि you know cyber security, yes I know cyber security, मैं जानता हूँ कि phishing क्या होता है, malware कैसे होता है, ransomware कैसे होता है, spyware क्या होता है, इसको कैसे block करते हैं. These are the only part of cyber security, cyber attacks. So spyware is like something is going to monitor my systems और वहां से मेरा डेटा को वो मतलब गैदर करेगा, राइट. कुछ भी मोबाइल फोन्स होता है, कोई कंप्यूटर होता है, और डेटा को वो बेसिकली क्लोजली मॉनिटर करके उसके बेसिस पे वो किसी न किसी तरीके का हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा. तो स्पाईवेयर जस्ट काइंड ऑफ द जस्ट डूइंग द स्पाइंग एक्टिविटी इन माय मशीन्स, माय सर्वर, माय डेटा, वो करना. ट्रोजन्स लाइक समथिंग लाइक कि एक तरह का आप लोग नॉर्मल जो वायरस होता है, वायरस और ट्रोजन्स यू कैन से लाइक सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है, प्रोग्राम में इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल हो जाता है, और दे आर कीप इंक्रीजिंग. जैसे वायरस आ जाने से आपकी फाइल नहीं खुलती है, करप्ट हो जाती है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, राइट. तो वो आपके एक तरीके से मालवेयर का ही टाइप है, और उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी डिग्रेडेड. और ये एक तरीके का मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाता है. अभी इसलिए आप कंप्यूटर में जब भी खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो यू इंस्टॉल द ट्रोजन्स के आप या एंटीवायरस, वायरस आप जो भी है ये सब इंस्टॉल करते हो, ताकि मेरा सिस्टम, मेरे सर्वर्स जो हैं they cannot download any hidden and harmful files जिसमें हमारे सिस्टम को मतलब करप्ट कर दें, राइट. सो ट्रोजन, वायरस, ये सारी चीजें भी अगेन मालवेयर के पार्ट हैं. दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन योर नेटवर्क और सिस्टम. दूसरी चीज होती है डीडोस. अब डीडोस क्या होता है? डीडोस एक ऐसा अटैक होता है कि लेट्स एज्यूम दैट कि मान के चलो कि आपका एक कंपनी है, राइट, और आपकी कंपनी में बहुत सारे डिवाइस हैं. सो आपकी कंपनी में मान के चलो कि दिस इज योर राउटर, राइट, सॉरी, सो मान के चलो कि दिस इज योर राउटर. ये राउटर कनेक्टेड है हमारा इंटरनेट से, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है. एंड दिस इज योर लैन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके पीछे हमारा लैन है, सॉरी, दिस इज माई लैन. सो डीडोस अटैक में होता क्या है कि मान के चलो कि ये मेरा कोई हैकर यहाँ बैठा हुआ है. जस्ट थिंक अबाउट, यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ है. सो अगेन मैं चाहता हूँ कि आपके जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसी भी तरह का बिजनेस में हो, यू आर डूइंग एनी बिजनेस, आई डोंट केयर, बट हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाए. जैसे मान के चलो कि आप बैंक का ही बिजनेस कर रहे हो. अब बैंक का जब बिजनेस आप कर रहे हो तो आपके लोग बहुत सारे क्यू में खड़े हैं यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन्स करने के लिए. पैसे किसी को निकालना है, किसी को डालना है, किसी को चेक लेना है, किसी को कुछ और अलग अलग एक्टिविटी करना है उनको, राइट. So they are having a different purpose in the bank, and if you want to like सब कुछ स्मूथ चले तो आपके बैंकिंग सिस्टम के जो आपके जो पैरामीटर्स हैं उसको, जो नॉर्म्स हैं उसको आप अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा. बट समहाउ इट इज नॉट मेंटेन्ड, और किसी बंदा ने जो यहाँ पे हैकिंग के लिए बैठा हुआ है, राइट, इसने क्या किया कि डॉस अटैक कर दिया. डॉस अटैक में होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आपका 100 MPS का बैंडविड्थ है और आपके यहाँ से 50 MPS का ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनेट पे इन एंड आउट हो रहा है, स्टिल यू हैविंग अ 50 MPS बफर. बट कोई इंटरनेट पे बैठा हुआ बंदा, इसने आपको 150 MPS का ट्रैफिक भेज दिया इस इंटरफेस पे. अब 150 इंटरफेस ट्रैफिक हैज बीन लैंडेड ऑन योर इंटरफेस. अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि योर यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी मोर देन 100% और इक्वल टू 100%. योर यूटिलाइजेशन इज गोइंग टू बी 100%. And if your utilization is going to be 100%, you probably not able to process anything. मतलब आपका जो इन से आउट का ट्रैफिक है that is not going to possible. Out to in ट्रैफिक है that is also not going to possible. क्योंकि आपका सब कुछ चौक हो गया, सब कुछ चौक हो गया, मतलब आपके पूरे रिसोर्सेस खा गया वो अटैकर ने. अटैक इसने ना आपका कोई मालवेयर डाला, ना आपका सिस्टम हैक किया, ना आपका कोई वायरस डाला, ना उसने कोई अटैचमेंट फिशिंग मेल किया, बट स्टिल you are disturbed. You got my point, guys? कि उसने किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया, उसी तरह का अटैक नहीं किया, ना वायरस, ना ट्रोजन, ना वॉर्म, ना एडवेयर, ना स्पाईवेयर, कुछ भी, ना बॉटनेट, ये सारे किसी भी एक्टिविटी को नहीं किया, लेकिन उसने डीडोस किया. डीडोस से आपका रिसोर्स इज गोइंग टू बी ब्लॉक एंड यू आर हेल्पलेस. You are helpless. So you should also know how to protect our network from any DOS or DDoS attack.
सो ये साइबर सिक्योरिटी जब भी हम बात करते हैं तो जो भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, दे हैविंग द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑल. दे अंडरस्टैंड द फिशिंग, they understand the malware, they should know how to protect from the malware, they should know how to protect from the vulnerability or ransomware attack, they should know how to protect from the spyware, and they know how to protect from the Trojan virus, DDoS, और जितने भी अटैक्स होते हैं, वायरस, अनवांटेड एप्लीकेशन, इनको फिल्टर करने आपको आना चाहिए. वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, और जो हमारे रिस्क पेज होते हैं, बॉटनेट होते हैं, मैलिशियस एक्टिव कंटेंट, फ्रॉड प्रोटेक्शन होता है, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS होता है, सस्पिशियस डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए. So these are the part of the cyber security. So if you are want to become the cyber security, again you should know the basic fundamental of the firewall. अगर आपको firewall नहीं आती है, then you probably not become a very good cyber security engineers. कहीं ना कहीं आपको सीखना ही पड़ेगा, right? So this is what I wanted to cover in today's session. मैं आप लोगों को try किया कि I'll give the basic fundamentals of next generation firewall. I'll try to give the good idea of the cyber security. I try to compare both of the features, firewall and cyber security के domains क्या होते हैं. मैं example देके बताने की कोशिश किया. Now it's your turns, guys. You can ask any question from me, and I'll try to answer those queries. Feel free to ask anything. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग रणवीर कुमार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बताइए. सर अगर हमारे पास कंपनी में या कहीं पर भी डीडोस अटैक होता तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारे पास डीडोस हुआ? पता कैसे करेंगे डीडोस अटैक हो? रैंसम में तो ये होता है कि रैंसमवेयर में तो ये होता है कि सर हमारी फाइल इनक्रिप्टेड हो जाती है तो हमें पता लग जाता है. लेकिन सर अगर डीडोस होता तो डीडोस भी होगा तो भी आपको पता चल जाएगा. डीडोस अटैक होगा, सो यू विल कम टू नो कि आपके जो भी कम्युनिकेशन होगा सारा ब्लॉक हो जाएगा. आप कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई पेज नहीं खुलेगा. सो आपकी पूरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगी. सो द ओनली वे, जब आपके पास डीडोस प्रोटेक्शन नहीं है एंड सडनली आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिसीव हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, इंटरफेस पे दो तरह के हमारे पास होते हैं ना. जैसे मैं एक मिनट लैब खोल लेता हूँ, पता नहीं लैब मैंने चालू नहीं किया है, बट आप लोग को लैब दिखाता हूँ जो आप लोग. लेकिन सर कंपनी में क्या होता है कि अगर कोई विंडो अपडेट लगा देता है और कुछ लगा तो भी हमारा यूटिलाइजेशन हाई चला जाता है सर उसको. तो अगर हम मॉनिटर करते हैं तो वो भी हाई दिखाता है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे पास अगर कोई पैचिंग हो रही है, दैट इज गोइंग टू शो द हाई, वो हमारे पास दिखाएगा. बट लेट मी जस्ट ओपन वन ऑफ द लैब टोपोलॉजी जो आप लोग करोगे. एक क्वेश्चन है. यस प्लीज आस्क. वो थोड़ा सा फीचर वाला है. एक्चुअली मुझसे इंट्रो में पूछा था कि अगर एचए में एक्टिव पैसिव में अगर मेरी एक्टिव फायरवॉल का अगर मैं ओएस अपडेट कर रहा हूँ तो क्या वो ओएस अपडेट सेकंड फायरवॉल में जाएगा या नहीं जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन. आपने क्या आंसर दिया? देखो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर एक्टिव और पैसिव अगर होना है तो अगर ओएस में अगर मैच नहीं करता तो दोनों में एक्टिव और पैसिव हो नहीं पाएगा. ठीक है. लेकिन एक चीज और देखी थी कि एचए के अंदर सिर्फ एचए कॉन्फ़िगरेशन ही जो होती है जो आपस में सिंक्रोनाइज होती है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज होती है. तो मेरे हिसाब से अगर ओएस अपडेट हो रहा है तो भी अपडेट हो जाना चाहिए. नहीं, एचए कॉन्फ़िगरेशन होती है बट दैट ओएस इज ऑलवेज लोकल टू द फायरवॉल. ओके. लोकल टू द फायरवॉल, ओएस हमेशा आपका लोकल टू द फायरवॉल होता है. हाँ, मतलब कि मेरे लॉजिकली ये मेरा आंसर एक तरह से ठीक था कि भी अगर ओएस अगर मिसमैच हो तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो नहीं पाएगा. नहीं हो पाएगा ना. एचए के तो पहले रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको जब तक एचए ही अपनी आएगा ना ओएस, क्योंकि प्री रिक्विजिट ही है. आई थिंक यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था. एचए क्लास में थे ना आप हमारी? हाँ, मैं था तभी मैंने दे पाया. तो हाँ ठीक है, वेरी गुड. अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो हमारा आता है कैसे पता चलेगा. तो यू आर राइट रणवीर कि हमारे पास जो डिवाइस होते हैं तो हमारे पास अपलिंक, कभी हमारे पास पैचेज अपडेट होते रहते हैं ना, ऑल राइट. सो हमारे पास जो अपलिंक पोर्ट होता है, जैसे मान के चलो कि इथरनेट 0x2 का जो पोर्ट हमारा, सॉरी. हाय पंकज सर, आई एम गौरव हियर. हाय गौरव जी, हाउ आर यू? आई एम गुड. पंकज जी, मैं ये कह रहा था, मेरा एक्चुअली मीटिंग चल रहा था माइग्रेशन का, करीब वो हाफ एन आवर के जगह 1.5 आवर्स हो गया. तो मैं कुछ देख नहीं पाया, जस्ट लॉग इन किया हुआ था मैं. तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि इसका एक्सेस, मुझे लैब का एक्सेस नहीं मिला है इसका भी.
मिल जाएगा सर, आपको लैब एक्सेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छा है। अच्छा मैं हाँ अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी सर? कल मिल जाएगा रिकॉर्डिंग आपको। कल मिल जाएगी ना? हाँ एक्चुअली माइग्रेशन था, उसमें फायरवॉल भी कनेक्ट था एचडी लैन एचडी एक्सेस स्विच में, तो उसी का कॉल चल रहा था मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। मस्ट वॉच, रिकॉर्डिंग जरूर देखना आप लोग, जो मिस जी कर जी दिए हो जी ना जी। देखना जरूर, क्योंकि बहुत मैंने बेसिक फंडा चीजें कवर किया है एंड विल ट्राई टू कवर दिस बेसिक थिंग। अभी 1-2 क्लास और ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अभी तक हमने कंटेंट स्टार्ट भी नहीं किया पालो अल्टो का। ओके ओके। सो कमिंग टू द पॉइंट रणवी, सो हमारे पास ये इंटरफेस है, यू कैन सी हमारे पास 2 तरह का ट्रैफिक है कि हम इनपुट एंड आउटपुट। हमेशा जब हम बात करते हैं आउटपुट मतलब हमारा ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा है, इन मतलब ट्रैफिक आ रहा है, तो कभी भी आपका इन ट्रैफिक, जैसे ये पीसी पैच अपडेट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका ट्रैफिक ये एकदम से बढ़ जाए, बट इतना नहीं बढ़ेगा कि आप ओवर यूटिलाइज हो जाओ। क्योंकि अगर आप नेटवर्क डिजाइनर हो, आपने देखा है कि मेरा एप्लीकेशन पैच अपडेट करने में 90% यूटिलाइज हो रहा है, स्टिल आपके पास 10% का बफर होना चाहिए। और ये भी आप प्रोडक्शन टाइम में तो करते नहीं हो, नॉन प्रोडक्शन टाइम में पैच अपग्रेड करते हो ना, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम में अगर आप प्रोडक्शन पैच अपग्रेड करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी मेक सेंस, क्योंकि आपका नॉर्मल ट्रैफिक है वो आपका किल होगा। सो ऑलवेज पैच पहले आपका होता है नॉन वर्किंग आवर में। सो अब वर्किंग आवर में अटैक होता है मान के चलो, सो आपका एवरेज आपका ट्रेंड होता है, आपका टूल होते हैं कि मेरी यूटिलाइजेशन कितनी है डेली का। सो यू कम टू नो 60% यूटिलाइजेशन है, 70%, यही एवरेज रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, 60 to ये तो 70% पर डे मैं का। सोलर वर्ल्ड यूज करता था तो वहां से निकाल लेता था। हाँ सोलर विंड से। सो यू कैन पुल आउट द रिपोर्टिंग, बट सडनली आप देखते हो कि यार मेरा रिपोर्टिंग का जो नॉर्मल बिजनेस आवर में 100+100% जाने लगा, तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। सो दिस इज ओनली इंडिकेशन कि आपके पास कुछ अटैक हुआ है, डॉस अटैक, क्योंकि उस केस में आपका यूटिलाइजेशन एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये तरीका होता है बेसिकली। हाँ एक्चुअली बताइए। क्या होता था सर, कई बार ना पीओसी चल रही होती थी साथ में, तो पीओसी चलती थी, उनका डेटा भी जाता था और विंडोज अपडेट या बैकअप भी लगा देते थे साथ में। तो सोलर विंड से मुझे पता लग जाता था कि हाँ किस सिस्टम पे ज्यादा जा रहा है अभी। लेकिन सोलर विंड आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन में तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा हमारा टॉप टॉगर है, कौन सा एप्लीकेशन मेरा किल कर रहा है, तो वो भी देख आपका। अब आपको अनोन से ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा किसी रीजन से, अनोन आईपी से, अनोन एप्लीकेशन के लिए, यू कम टू नो कि दिस इज नॉट माय एप्लीकेशन, दिस इज नॉट माय आईपी एड्रेस। तो एक हिंट मिल सकता है आपको, राइट? अग्री कर रहे हैं मेरी बात से? राइट सर, राइट। हाँ सर एक छोटा सा डाउट। बिल्कुल बताइए। मतलब मेरे मैनेजर कहते थे सर कि एक वो एक मिनट रणवीर जी, मुमताज मैम का एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं, फिर यू कैन अगेन आस्क। यस मुमताज जी बताइए। सर आप पाला ऑल्टो सीखे तो Zscaler पे काम कर सकते बोले ना? इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, ठीक है। आप पालो अल्टो सीख कर आप सिक्योरिटी, राइट, और साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को आप अच्छे से सीख सकते हो, सिक्योरिटी प्लस साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को, राइट, जो मैं बात कर रहा हूँ। बट Zscaler की प्रोडक्ट पे काम करने के लिए आपको Zscaler प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंटरफेस के बारे में ऑलमोस्ट सारे काम करने का तरीका सेम है, राइट। यू कैन कोरिलेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, आप चीजों को कोरिलेट कर, लेकिन Zscaler का इंटरफेस जो है ना वो अलग है थोड़ा सा। तो आपको Zscaler प्रोडक्ट पे आपका थोड़ा सा, आपको कम से कम एक्सेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर उस पर चलाना पड़ेगा। नहीं सर, थोड़ा सा ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट में Zscaler पे वर्क है, लेकिन मैं नहीं करती, मेरे टीममेट्स करते, जो एक साइट का रन बुक देते, वो साइट में एक वर्चुअल आईपी लेके उन्होंने वीलैंस को ऐड करते सर वो साइट पे। अच्छा अच्छा, हाँ वैसा राइट। है Zscaler पे काम। तो देखो बेसिक चीज तो आप कर सकते हो, अगर आपको एसओपी है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी, रन बुक ऑलरेडी है, सो यू कैन डू, एंड आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, Zscaler पे काम करने के लिए आपको Zscaler की थोड़ी सी फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, मतलब कि Zscaler प्रोडक्ट क्या होता है, इसका ओवरव्यू डैशबोर्ड कैसा दिखता है। जैसे पालो अल्टो का आप लोगों को पता नहीं, मैं दिखाऊंगा एक एक करके, वैसे Zscaler किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। देन यू कैन कोरिलेट द थिंग्स, यहाँ वहां पॉलिसी बनती है, यहाँ पॉलिसी बनती है, वहां फाइल ब्लॉकिंग होती है, यहाँ भी होती है, वहां भी हाँ आप वायरस सर। प्रोटेक्ट करते हो, यहाँ भी होता है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन डैशबोर्ड का एक्सेस होना चाहिए, तो आप अगली बार से लॉगिन करके देखना, जो मैं यहाँ बताऊंगा वहां पे आप रिलेट करने की कोशिश करना, देन यू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जो हमारे प्रोजेक्ट में पूछते रहते सर, टनल अप हो रहा क्या बोल के जो मेरे को समझ में नहीं आता, वो एक वर्चुअल आईपी लेके टनल अप बोल के कैसा बोलते बोल के। हाँ नहीं नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये कीप लर्निंग, जो भी ट्राई आप कर रहे हो,
Palo Alto सीखो, आप अभी जो CCNA CCNP चल रहा है, you learn each and everything, आप टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे आप सीखोगे, then you come to know कि हाँ ये सारी चीजें क्या होती हैं, right? I'll take one special session, इसी बीच में हम लेंगे Zscaler के बेसिस पे लेंगे, जिसमें हम सिर्फ Zscaler के बारे में बात करेंगे और उससे कैसे हमारी Palo Alto से टनल बनती है, कैसे राउटर से हमें टनल बनती है, कैसे Zscaler पे हम ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करते हैं। तो मैं आप लोग एक सेशन लूंगा प्रोबेबली इसी वीक या नेक्स्ट वीक में लूंगा, तो थोड़ा सा मैं आप लोग आइडिया दे दूंगा कि बिकॉज आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ Zscaler एज वेल, तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है, वर्चुअल आईपी क्या होता है, टनल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, GRE क्या होता है, आईपी से टनल कैसे बनती है, पैक फाइल क्या होता है, GCC क्लाइंट कनेक्टर क्या होता है। तो एटलीस्ट आप लोग को इतना आइडिया हो कि हाँ कुछ तो आता है मुझे, कोई ऐसा बोले तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ तो बोल सकता हूँ, राइट? ओके, यस मिस्टर रणवीर, कुछ आप पूछ रहे थे, यू कैन कंटिन्यू और एनी अदर वन वांट टू डिस्कस कैन डू। No, sir, my side no. Okay, that's good. Any other question, guys, or we are good to close this session, right? Because I believe इस तरह की लैब आप लोगों को मिलेगी, आप लैब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप लोग इंटरनेट से, and you can just have a discussion. Any, do you have any question you want to ask? Hello, Any. Good morning. I believe you able to hear Annie? You want to ask something? Yes, can you hear me? I can hear, but not very clear. Okay, can you hear me now? Yeah, it's better now. Yeah. Okay. Yeah, so I have one question. So the Zoom link, is it gonna be same Zoom link every day, or like is it No, different? it's a temporary. This week will be the temporary. From next week onward, the permanent Zoom link will be the shared. Okay, for everyone. Okay. So and when will be the when will we start the actual lab class? I mean lab section. This Friday we having the firewall configuration class. So we start with the this initial configuration of the firewall. So the firewall configuration will start from this Friday. We having the actual configuration of the firewall. So we'll start from here. Okay. So this Friday we'll start the initial configuration of the firewall. So like I request everyone to join, because this is the baby step to just how to configure the Palo Alto firewall from a scratch. I'll tell step-by-step process how the firewall is going to configure, how the console is going to be taken, how the GUI access is going to be taken, और क्या हमारी firewall में default configuration होती है ना, how it is going to be configured. So we'll discuss each and everything this Friday. So don't miss my class this Friday, okay? So Pankaj, sir. Yes, please. Yes, I'm Gaurav here. So I want to know when I will get the notes and like books, ebook for the Firewall Alto. So I will just read it and understood all the things. I'll discuss your case, after this meeting. Okay. Definitely you'll get very soon. Today or might be tomorrow. Anyhow, we'll get that. Okay. Okay. No, sir. Okay. So one quick question. Yes, Sheikh, बताइए. The the Panorama is a part of the class or what? Yes, the Panorama, you'll get the complete understanding the Panorama, even you'll get the labs. Only one issue we having in the Panorama, because the Panorama device, we don't have the lab. So all 100% feature cannot be tested. But I'll tell each and every concept. If you're having already Panorama, so I'll tell you how the device can be added in the Panorama, how the object group can be created, what is the pre-rule, what is the post-rule, what is the licensing is going to happen, and ऑब्जेक्ट ग्रुप कैसे बनता है, शेयर्ड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा पैनोरामा के अंदर. सो दिस इज द ओनली लैब which is not going to 100% completed due to the license is very costly. Okay, so this is the reason we don't have. But if you are having a license based Panorama you want to share, I can explain each and everything. But rest of the things, like even the global protect, you can see here global protect lab is going to be 100% completed, IPsec, everything. So none of the content is going to be without lab. So even Panorama is also having lab, but it's a 90%, I can say 10% part, probably due to the unlicensed, it is not going to work. And the all rest of the configuration, even we having the license based firewalls where everything can be tested. So no need to worry about that. Okay. So two more questions which I got in the interview. So interviewer asked me what is the difference between Cisco ASA, Cisco ASA and Cisco and a Palo Alto Firewall. So I told them, Palo Alto Firewall is a stateless and no, firstly I told them to Cisco ASA earlier it was a stateless, now it is upgraded to stateless, and the another one is stateful. Yeah. Stateful. Yeah, you're right. Earlier it was a stateless, and
now it is upgraded to stateful. So he told me you are wrong. Earlier it was a stateful. Like No, he asked me like that. your interviewer was probably, I'm not going to blame, but Yeah. I'll cover this stateful firewall feature and a stateless firewall feature. When I'll compare that, so if I'm talking about the next generation firewalls, even the Cisco ASA next generation firewall, I'm talking about the next like legacy firewall, they all are the stateful firewalls. Yes. They Now maintain it is the states. upgraded to stateful. Earlier it was a stateless, right? Yes, stateless firewalls. So I'll discuss this special, what is the stateful, because this is the bad question of the interview. आप अगर interview देने जाते हो, this question must be going to be asked. What is the difference between the stateless firewall versus the stateful firewall? And if you don't have the clear answer, probably you will be not able to crack. Okay, so I'll cover these things in one session. Okay, where I'll explain what is the And- stateful and stateless. Yes. What is the second question? One interview asked me about the what is the difference between a UTM and NGFW. So UTM, yeah. I told them, so I don't know about the UTM, but and I told about the NGFW only. So you know NGFW, right? Yes. So UTM is nothing. It's again like it's like a module. UTM is the Unified Threat Management module, right? So Yes. it's like how to manage your threats, right? It's like Yeah. info says like what any threats, like whatever the threats I discussed, like you can see there's malware, phishing activity, any Trojan activity, any kind of the vulnerability. So how the threat is going to be managed? There is two module, IPS, IDS, UTM. These are the part of the interrelated. But Yes. when you talk about the next generation firewall, these in Palo Alto, these everything, no need to buy any IPS, IDS module, right? Or UTM module. These all are integrated in next generation firewall in the Palo Alto. So you can see, if you go in the Palo Alto firewall, you'll find the antivirus scanner. It is going to take a scan that your virus, and based on the scanning, they are going to take an action. NT spyware, vulnerability, like URL filtering, DOS, wildfire, zero-day attack. So everything is going to happen in the next generation firewall without installing any kind of the additional modules, right? No, nothing. And you single dashboard, you can see every logs, every vulnerability, every kind of like whatever happening in your network, like ACC command center, application command center in available in the Palo Alto file. Later I'll show you. Those are all are going to show the 360 view for the regular basis what is happening inside of your network. So no need additional any kind of UTM module to just manage those things. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. सर मैंने कुछ मैसेज भेजे बार देख कर लेना। अच्छा मैंने नहीं देखा क्योंकि ओके सो कंटिन्यू क्लास फ्राइडे से होगी? नहीं Wednesday we have one base session again. This Wednesday we having the one base session again. Probably I'll discuss the stateful and stateless firewalls, and you guys can ask any questions like today. And from Friday we'll start doing the firewall configuration. Okay. ये कल क्लास नहीं क्या? नहीं कल नहीं है, वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को है। वेडनेसडे और थर्सडे भी होगी, फ्राइडे भी होगी? नहीं वेडनेसडे के बाद फ्राइडे के। इस वीक 3 क्लास है, नेक्स्ट वीक से 4 क्लास होंगी अब। अच्छा, आज क्लास है, हाँ मंडे टू थर्सडे रेगुलर होगी। अभी इस वीक 3 क्लासेस हैं, आज एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बट नेक्स्ट वीक यू विल गेट द ओनली 4 क्लासेस मंडे टू थर्सडे। अगर कोई मिस होता देन विल डू द फ्राइडे। ओके। अच्छा आप पूछ रहे कि सर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। I'm sorry, which day was it? Like Thursday, Wednesday? I mean Wednesday, Thursday, and Friday. This week only we having a class. Today I have one class, Wednesday having a second class, and Friday having a third class. Okay. This week. So we won't. Okay, we won't have class on Thursday, right? No class on Thursday. Okay. But next week onward, from next week, Monday to Thursday, regular 4 class we have. Friday no class. Okay. Okay. So today in this week only on the Thursday or also in the tomorrow? No, tomorrow there is no class. This week, let me just open my calendar. Okay, sure. This week, Monday we have class. Next class we having a Wednesday, and after that we having the Friday. Okay. Okay. From next week onward, all class will going to have a Monday to Thursday. Okay. All classes will going to happen. Okay. This way. Okay. So प्रीतम पूछ ही लो ना आप, मैं कब तक पढ़ूंगा? कोई दिक्कत है पूछने में? लंबा चौड़ा मैसेज है। एक्चुअल में क्या था कि एक मेरा ना इंटरव्यू था रेली गियर के साथ आज ना। हाँ ठीक है। तो
उसमें उन्होंने मुझसे रियल टाइम बेसिक क्वेश्चन पूछे थे सारे के सारे। अच्छा तो ठीक है। वो अब एक आध तो मैंने आंसर गलत दिया, लेकिन मोस्टली सारे ठीक थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको मैं सेकंड राउंड के लिए भेज देता हूँ आपका नाम, तो आपका सेकंड राउंड होगा और वो उसमें टेक्निकली से भी ज्यादा क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब जितना मैंने सीखा वो तो मेरे हिसाब से अब एक हद तक बेसिक है या फिर बहुत हद तक है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो आंसर दे दूंगा, लेकिन अगर रियल टाइम से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो हाउ कैन आई आंसर। तो मुझे वही चाहिए, एक हेल्प चाहिए। बीस सर से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि तो जस्ट रियल टाइम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। रियल टाइम क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव टू कॉन्फ़िगर अ फायरवॉल, राइट? जो आप ये क्लास आपने नहीं किया है, तो आप कैसे बता पाओगे फायरवॉल का स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? क्या प्रीरिक्विजिट होती है ना, आप नहीं बता पाओगे ना, राइट? नहीं। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द अप्लाइंग द सिक्योरिटी पॉलिसी इन द पालो आल्टो फायरवॉल? और किसी फायरवॉल कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी में अप्लाई करते हैं, पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है? हैव यू डन दिस क्लास? हाँ की थी, नहीं ये वाली नहीं की थी, स्टार्टिंग क्लास की थी। तो ये नहीं किया था आप, तो नहीं बता पाओगे, राइट? पर मैंने इसकी रिवीजन कर चुका हूँ, तो मैंने इसके आंसर ठीक दे दिए है, मैं बता रहा हूँ, देखो दीज आर द थिंग्स, ये रियल टाइम क्वेश्चंस है। व्हाट आई एम आस्किंग, इफ आई एम गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज द वर्चुअल राउटर इनसाइड द पालो आल्टो फायरवॉल एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर? उन्होंने सर क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको दो बताता हूँ। एक तो जो मैंने अभी आपसे पूछा एचए वाला, कि अगर एचए है और मैं अगर अपना ओएस अपग्रेड कर रहा हूँ तो क्या दूसरे में अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, वो भी ये था कि मेरी कंपनी है, मेरे पास सर्वर रखा इन हाउस है, उस पर वेबसाइट है, तो मेरी कंपनी में तो कोई भी उस वाले सर्वर की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, वेबसाइट को। अच्छा ठीक है। तो आंसर तो मैंने दे दिया कि भाई पहले तो मैं चेक करूंगा अपने यहाँ से, वही जो ट्रेस रूट के थ्रू कि मैं गेटवे तक जा रहा हूँ, नहीं जा रहा। दूसरा मैंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोर्ट ब्लॉक हो मेरे सर्वर पे, टीसीपी वाला जो HTTP सर्वर पे नहीं, फायरवॉल पे। नहीं, फायरवॉल का तो मैंने बोल दिया कि मैंने चेक करूंगा। उसने बोला कि सब फायरवॉल पे ट्रैफिक अलाउ हो रहा है, फायरवॉल पे ट्रैफिक बाहर जा रहा है, लेकिन वो आपको वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, वेबसाइट एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियस है कि वो कहने के सर्वर पे उसका पोर्ट ब्लॉक होगा, HTTPS वाला, TCP वाला। आईपी आपके सर्वर पे पोर्ट अलाउ नहीं हो, आईपी व्हाइट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कई बार जो सर्वर्स होते हैं ना, आईपी व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपका सोर्स आईपी जो भी पब्लिक आईपी, जैसे कई सारे कंट्री होते हैं, इंडिया में जैसा, ठीक है, इंडिया के इनकम टैक्स की वेबसाइट है, मेरे इन हाउस ही है, सर्वर मेरे इन हाउस ही है। तो इन हाउस होने के बाद भी मैंने ये बोल रखा है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे ये क्या बोलते हैं कि हमने एक टोपोलॉजी डिस्कस की थी जिसमें मैंने डुअल नेट बताया था ना आपने। तो मैंने बोला था कि मेरा सर्वर ये पर्टिकुलर सर्वर मेरे इसी आईपी से एक्सेस होना चाहिए, राइट? अगर वो आईपी नहीं लेके जाएगा तो वो उसी को बोलते हैं आईपी व्हाइट लिस्टिंग। सो इफ यू आर नॉट गोइंग विद दिस आईपी एड्रेस तो वो भी नहीं एक्सेस होगा, आपका पोर्ट अलाउ नहीं होगा तो भी नहीं एक्सेस होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो सर्विस है दैट इज अलाउड इन माय सर्वर, और मेरी जो सोर्स आईपी लेकर आ रहा है उससे क्या उसका एक्सेसिबिलिटी अलाउ है। तो अगर नहीं अलाउ है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ब्लॉक। हाँ, अगर फायरवॉल सही है। हाँ जी, पर सर वो एचआर ने आंसर ये सुनना चाह रहा था जो मैंने दिया था कि वो वाला पोर्ट ब्लॉक वाला, कह रहा एब्सोल्युटली राइट। सर मे बी आईएसपी का इशू भी हो सकता है। कौन सा? नहीं, लोकली होस्टेड है, लोकल है, मेरे इन हाउस का है वो। तो ये तो सारा बता दे, तो उसी टाइप के सर क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि दोबारा पूछेंगे। तो these are the Pritam, trust me, whatever the topology I have done a discussion, जो हम करते हैं, these are the real based scenario only। कुछ भी ऐसा हवा में नहीं है। These all topology HA is real time, policy is real time, यही चीजें होती है रियल फायरवॉल में, अलग से नहीं होती है। तो हमारी माइंडसेट में ये निकाल देना टोपोलॉजी हम जो भी कर रहे हैं दैट इज अ वर्चुअल, हम लैब कर रहे हैं। These are the real labs। एक्चुअली जितना हम यहाँ कर रहे हैं ना उसका 10% भी प्रोडक्शन में आप नहीं करते हो, ट्रस्ट मी। बिल्कुल सही कह रहे हो, सारा आप 10% भी आप नहीं करोगे अपने प्रोडक्शन में। आपको सिर्फ एसीएल बनाने को मिलेगा, पॉलिसी बनाने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने को मिलेगा, कभी आप ओएस अपग्रेड कर दोगे, कभी आप एचए फेल ओवर कर दोगे। जो एचए कॉन्फ़िगरेशन है, फेल ओवर टेस्टिंग है, लिंक मॉनिटरिंग, पाथ मॉनिटरिंग, आईपी से एक्सटर्नल क्रिएशन, ग्लोबल प्रोडक्ट क्रिएशंस, बाकी पॉलिसी, वल्नरेबिलिटी प्रोडक्शन, एनटीएस स्पाईवेयर, जो हम टेस्टिंग किए हैं ना, दैट is probably जो L4 के बंदे होते हैं they also not get that much time to just do all testing, क्योंकि वन टाइम डिप्लॉयमेंट होता है। जिस टीडी ने आपको बना के एक बार दे दिया वो बन गया, अब वो अलग गया। जब तक उस पर कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो भी मॉडिफिकेशन होगा तो ऑपरेशन के बंदे बहुत कम करते हैं, दे आर डन बाय द हायर लेवल ऑफ द इंजीनियर्स। तो दिस इज समथिंग कि हमें ये दिमाग से निकाल देना है कि इंटरव्यूअर को ये हमें बताना है कि आई एम इंजीनियर, आई हैव डन माय रियल पालो आल्टो फायरवॉल, ये रियली फायरवॉल है।
कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। आप ये रियल फायरवॉल खोल के देख लो, एक साथ बैठ जाओ, और वर्चुअल आपको सेम ही सब कुछ दिखेगा। तो ये सब कुछ रियल ही हमारा है, ठीक है। तो ये दिमाग में बात नहीं रखना, ठीक है। प्रीतम बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि मैंने रियल पे काम किया है। मॉडल याद कर लो, कौन कौन सा मॉडल है ये देखो, ये याद कर लो मॉडल। मैं बता रहा हूँ फिर से, ये याद कर लो कि ये मॉडल है 220 फायरवॉल पे मैंने काम किया है, 820 पे काम किया है, बोलो 3220 पे मैंने काम किया, 7050 पे काम किया है। तो आपको बोलना है ये सारी चीजें। खान कुछ बोल रहे थे आप? 220 बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 420 आ गया, 220 आ गया है, लेकिन अभी भी इन सपोर्ट में है, एंड ऑफ लाइफ हो गया। लेकिन जिसका चल रहा है उसका चल रहा है, अभी भी सपोर्ट है, इसका सपोर्ट बंद नहीं हुआ, बट सेल इसका बंद हो गया, 420 आ गया। सर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नेटवर्क में कितनी फायरवॉल लगी? एक मिनट, एक भाई एक खान जी आप कंक्लूड कर। हाँ, एक आपके नेटवर्क में कितनी फायरवॉल लगी, एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके नेटवर्क में फायरवॉल डिपेंड करता है ना कि कितनी साइट्स हैं। एक साइट पे, जैसे एक साइट होती है मिनिमम, उस पे 2 फायरवॉल हम लगाते हैं, एक आपका एक्टिव होता है, एक आपका पैसिव होता है, ठीक है। तो ये जनरल आर्किटेक्चर होता है जो आपको ग्लोबल इंडस्ट्री फॉलो करती है। एक फायरवॉल नहीं लगाती है, 2 ही पेयर में लगाते हैं, एचए में कन्फिगर करते हैं, ताकि एक डाउन हो दूसरा ले ले। तो एक साइड पे आपकी 2 फायरवॉल, अगर 100 साइट है 200 फायरवॉल लगेगी आपकी। यही होगा आंसर इसका। तो आपको इस तरह से बताना है कि लाइक दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस कि इन आवर नेटवर्क्स वी जस्ट हैव द एचए फायरवॉल्स नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड, जिसमें 2 फायरवॉल्स लगती हैं। तो वन साइड हैविंग 2 फायरवॉल्स, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि माय ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 100 ब्रांचेज, सो 100 फायरवॉल्स लगेंगे या 200 फायरवॉल्स लगेंगे। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। ये सब फेक क्वेश्चंस होते हैं, राइट। आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि आप कितना सोच पाते हो, लॉजिकली कितना आंसर दे पाते हो। सर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे लास्ट कौन सा ऐसा आपने ट्रबल शूटिंग करी है कि जिससे आप करके थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करा या आपने हैप्पी हो आप करके, तो स्टेप बाय स्टेप बताओ कौन सी इसके लिए तो फिर मेरी क्लास ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी आपको, तभी पता चलेगा कि लास्ट ट्रबल शूटिंग आप कौन करके आया। मैं ट्रबल शूटिंग करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। प्रीतम किया था ना हमने? प्रीतम हाँ जी लास्ट वाला। तो ये तो बता दोगे ना आंसर, कैसे डीबग, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे थी? हाँ, कैसे मैंने आंसर में भी ये दिया था ना कि भी अगर मेरे ट्रैकिंग जा रहा तो मैं पहले पैकेट कैप्चर करूंगा, उसके बाद अगर नहीं भी होता तो भी डीबग करके बताऊंगा कि कहाँ पर इशू है, कहाँ पे एग्जैक्ट इशू, राइट। सो बिल्कुल ये तो हमारी यूएसपी है। ये तो हम ऐसे सीखेंगे कि आप लोग को बिल्कुल जिंदगी भर याद रहेगी चीजें क्या क्या है, पैकेट कैप्चर कैसे लेना है, डीबग कैसे लेना है, कैसे उसको पैकेट को, ये आखिरी वो तो सब दिमाग में छप गई जैसा आपने बताया। हाँ क्या शेख जी बताइए। हाँ जी बताइए। We can't do the debug early in the production, right? Because it utilizes more and more RAM and all these things. Completely agree. So we discuss multiple scenario. हम डिबग किस स्टेज पे जाके करेंगे, that we also discuss. This is the last resort कि जब हमारे सारे टूल खत्म हो गए and we not able to troubleshoot, that is the last gateway of resort कि हमारे पास डिबग करना है. So we have to take the cautious window. We have to inform our management team, and then you have to do the debug. It is not recommended to do in the any production environment debug. So वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में डिबग करना है. You are absolutely right. बट उससे पहले क्या क्या चेक करते हैं, उस पर क्या क्या लिमिटेशंस होती है पैकेट कैप्चर्स में, क्या क्या हमारे नॉर्मल ट्रबल शूटिंग में लिमिटेशंस होती हैं, और किस तरीके से डीबग इज गोइंग टू गिव द 100% करेक्ट आंसर, वो चीज हम देखेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर टैग में भी इंजीनियर बनते हो तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। समझे शेख? Yeah, thank you. Hello. Yes, please. Good evening, sir. Good evening, Sir, पंकज जी actually बताइए। today is my first class. Okay, welcome to class. हाँ, तो सर मैंने अभी क्वेरी डाली थी तो मेरे पास आज डेमो के लिए आया था ये, तो मैंने ज्वाइन करा था। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने अभी कितनी क्लासेस स्किप कर दी हैं क्या? कोई क्लास स्किप नहीं की अभी तक। आप चलो, ये सब बेसिक फंडामेंटल क्लास हो रही हैं। पीछे के 1-2 क्लास हमने बेसिक फायरवॉल के बारे में हमने बात किया था, राइट। तो वो आपके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जस्ट यू अंडरस्टैंड कि हम क्या प्रोडक्ट करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट क्या मतलब। अभी ऑफिशियली हमारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक थिंग्स, राइट। एक फाउंडेशन कोर्स होता है ना, वो हम कर रहे हैं। द मेन क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्राइडे, ओके। सो वो मिस मत करना आप लोग, ठीक है। फ्राइडे तक आप लोग को कोई क्लास, फ्राइडे के बाद कोई क्लास मिस नहीं करना है। इफ यू आर मिसिंग द क्लास, you are losing the valuable information from my सर side. अब नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास कैसे आएगा, या मुझे क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा सर, उसका प्रोसेस थोड़ा? हाँ, मैं आपके पास जिस नंबर से मैसेज आया होगा ना, उस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा आप, राइट। यस सर। आप मैसेज डाल दीजिएगा, आपसे कोई ना कोई कनेक्ट कर लेगा एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि कैसे क्या करना, ठीक है। आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम क्लोज करें। अगर आप लोग क्वेश्चन आप अभी डिस्कस करेंगे कि बाद में क्या करना था डिस्कशन? आपने कहा था लेट डिस्कस।
नहीं आपका जो केस है, I'll discuss with the separate team, okay? कि you'll definitely get, right? क्योंकि I know your case, so मैं आपको कराता हूँ अभी जिस क्लास के बाद है, ठीक है? आपसे Sure, नहीं, sure, मतलब sure. इंटरनल डिस्कस करके आप you'll get the information, okay? You'll get all Okay, okay, no information, issue. ठीक No है? issue, sir. No, sir. So if you guys allow me today, so we can wrap up this meeting for now, and we'll connect on the Wednesday, Sure, ठीक sir. है? Sure, sure. Thank you so much, Okay, sir. guys. Good night. Take Good care. night. Good night. Thank Bye. you. Take care. Take Good care. night. Bye. 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 Hello, everyone. Good evening, you all. Am I audible? Can someone confirm? Yes. Thank you so much. Good evening. Good evening. How are you, Gaurav? I'm good. Very well. What about you? Doing great. Doing great. What about Okay. others? बाकी लोग कैसे हो? ठीक हो सब लोग? All good, doing good, sir. How about Good you, sir? आनंद. एकदम Good बढ़िया। आनंद जी. बहुत दिनों बाद. Yes, कैसा sir. चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? जॉब वगैरह? Yes, sir. बहुत अच्छा चल रहा है। आपके Good. दुआ से पहला नौकरी तो लग गया, अब सेकंड स्विच के लिए फिर से कॉर्स ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जंप अरे कर सकूँ। अरे कोई बात नहीं, होगा 2 जंप होगा, 3 जंप होगा, 4 जंप, हमारी विशेष है। ट्रेनर ही ऐसा एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिनको नौकरी मिलने सबसे ज्यादा खुशी होती है अपने स्टूडेंट्स की। जैसे बाकी लोग थोड़ा जे फील करते हैं, बट ट्रेनर ऑलवेज फील हैप्पी कि उसके जो भी प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं और कलीग हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद गेट प्लेस, तो बहुत हैप्पीनेस होती है कि भाई चलो यार, मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान बढ़ रहा है, राइट? थैंक यू सर। All right, welcome. We all set to start. Let me share my screen. Okay, so welcome you all once again, GuiNet Technology. So आज हमारा last live session है in terms of demonstration. बाकी we'll start the closed group class after Friday. Okay. So आज जो भी पूछना होगा पूछ लेना. It's like more about the anything discussion, right? कुछ भी दिमाग में चल रहा होगा तो you guys can ask anything, कुछ भी, not only the follow to firewall. इसके अलावा भी अगर हट के भी कुछ बात करना होगा, you guys can have a discussion, ठीक है? So we'll have a very good discussion today, and also मैं कुछ आप लोगों को नए concept बताने की कोशिश करूंगा. That is going to be cover. Let me कुछ document भी खोल लेता हूँ साथ में. So you guys can understand कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. Good evening, everyone. Good evening, Vishal sir. Good evening. So, all right. So I believe most of the people already joined. Okay, let's start our session. Okay. So I believe you guys having the very good understanding after doing the some basic firewall understanding, right? So last class में हमने बहुत सारी चीज डिस्कशन किया था about the firewalls, right? कि firewall की क्या जरूरत होता है, what is the logical security, what is the physical security. So still we are doing the fundamentals, but Friday class is very important. We are going to do the live configuration of the Palo Alto firewalls. बिल्कुल day 0 वाली configuration है. So basically you will guys everyone will get the lab. So let me show you the lab layouts. तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसा आप लोगों को लैब करना है आफ्टर दिस सेशन. तो Pankaj sir, I did not get it. हाँ मुझे पता है. Do you get the video access and the Yes, documents? I got the access of videos and documents is very less, which you have in computer, that is very much, but I got access of little bit No worry, no document worry. access. Whatever document I'm going to share, that is going to be added in your folder. Okay, so we'll create the new separate folder where you'll get the all this class recording videos, and we just given for the reference, right? जो भी पिछले class का वो complete आपको मिला होगा because you registered since long, so you'll get the complete. But अभी तक class का अभी एक पूरा एक होता है ना कि जैसे पूरा एक सबका एक ग्रुप बनाना, वो भी बना नहीं है. That is going to happen on this weekend. So you'll get the entire day 1 from day 1 video session. जैसे आज हमारा day 1 मान के चलो या फ्राइडे को day 1 होगा, तो all classes का जो फंडामेंटल हमारे हैं firewalls के, उसके जो लैब गाइड्स है हमारी, वो जो स्टडी मटेरियल है, वो आपका जो भी लैब एक्सेस है, क्रेडेंशियल है, वो एवरीथिंग इज गोइंग टू प्रोवाइडेड. अभी तक लैब हमने किया ही नहीं है क्योंकि ऑफिशियली हमारा बैच स्टार्ट ही नहीं हुआ है. So that's why still not अभी तक बना नहीं है. तो अभी आपको इसलिए दे दिया गया कि you are like very excited to learn. तो अभी हमने दे दिया ताकि आप अपना वीडियो देखो और थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बना लो, ताकि you will have the more questions during the class, right? Okay. So गुड इवनिंग. hello, good evening मुमताज. How are you? कैसे हैं आप? हाय, ठीक हूँ. आप सर?
All good, all good, all good. Okay, so let me go in the Palo Alto lab. So guys, once we start the session, right? So everyone will get the link. This is the link, right? So this link can be accessible from the anywhere in the world. सिर्फ आपको क्या चाहिए? You need a internet access. आपके पास एक internet access होना चाहिए. कोई हार्डवेयर की लिमिटेशंस नहीं है. एक जैसे आप अगर अपने लैपटॉप पे गूगल खोल सकते हो, राइट, आप ईमेल खोल सकते हो, तो दैट लैपटॉप इज इवन द 4 GB रैम का भी लैपटॉप है जो आजकल मिनिमम आता है. तो अगर डेस्कटॉप भी है तो भी आपका ये लैब खुल जाएगा. जस्ट नीड अ इंटरनेट एक्सेस. तो ये लैब कहीं से भी एक्सेसिबल होगा. आपको सिर्फ करना क्या है कि जस्ट यू हैव टू कॉपी दिस URL. जैसे मैं इस लॉग आउट कर देता हूँ, राइट. सो आपको इस URL को कॉपी करना है और किसी ब्राउजर में जाकर इसको सिंपली पेस्ट कर दोगे आप, ठीक है. तो इस तरीके का आपके पास एक लैब का लेआउट खुलेगा, राइट. और इसको आपको यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, बट यू विल गेट द योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपके नाम से यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड मिलेगा आपके नाम से, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर, ठीक है. और जब भी आप लैब एक्सेस करोगे तो आप हमेशा HTML कंसोल यूज करोगे. 2 प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, या तो EVNG पे लैब मिलेगा या तो PNet पे लैब मिलेगा, बट इट इज गोइंग टू बी द सेम प्रोसेस. So somehow there is some wrong password. Let me try again. So इस तरीके से जब आप लैब खोलोगे then you'll get lot of labs here. जैसे आपको day 0 firewall configuration कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा. फ्राइडे को कैसे बिल्कुल जीरो से कैसे firewall स्टार्ट करना है. इस तरीके से बहुत सारे लैब आपको एक्टिव पैसिव के भी 2 लैब मिलेगी, मतलब एक्टिव की एक्टिव पैसिव की. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर. बहुत सारी लैब हम इसमें करेंगे जिसके अंदर हम आपको नेट, डुअल नेट, यूटर्न नेट, आपका सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, यूजर आईडी, राइट, बाकी जो कंटेंट आएगा वगैरह हुआ वो सारी चीज करेंगे, एप्लीकेशन आईडी, सारा कुछ हम इस लैब में करेंगे. बहुत सारी चीजें हम करेंगे. तो हर एक लैब का कुछ ना कुछ मीनिंग है, और ये लैब मैंने खुद डिजाइन किया है, और ये कस्टमाइज लैब्स हैं बेस्ड ऑन द रियल सिनारियो. जैसे कंपनी में जहां जैसा यूज होता है, तो आपको ग्लोबल प्रोटेक्ट की भी लैब मिलेगी. GRE टनल भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे बनती है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो. जनरली हम Zscaler के लिए बनाते हैं, बट इफ यू वांट टू नो हाउ द GRE इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, मैं बता दूंगा. लेयर 2 इंटरफेस मोड का एक डेडिकेटेड लैब है. इंटरविलन राउटिंग की डेडिकेटेड लैब हमारे पास है. नेट की हमारे पास भी लैब है डेडिकेटेड, नेट ट्रैवर्सल्स की, ठीक है. तो ये भी हम कर सकते हैं. देन हमारे पास एक्टिव पैसिव है, एक्टिव है हमारे पास. नेट कंप्लीटली हम करेंगे, पैनोरामा भी हम करेंगे, राइट. साइड टू साइड VPNs है, ये भी हम करेंगे, राइट. और हमारे पास ये कंटेंट आईडी, यूजर आईडी एंड वीवायर मोड के लैब्स हैं. तो बहुत सारी चीजें करेंगे थ्रू आउट द सेशन. जो कोर्स कंटेंट हमने डिस्कशन किया है डे 1 से, राइट, दैट ऑल गोइंग टू बी कवर. So this course is all about जो पहली बार ज्वाइन किए हैं, that is going to be cover in term of कि like आपका PCNSA क्या है, PCNSE जो भी सर्टिफिकेशन है, that both is going to cover it during this course. तो आप लोग बिल्कुल चैम्प हो जाओगे. I just trust on my words. यही दे सकता हूँ. और क्या कि my target is to you guys become zero to hero. अगर Palo Alto नहीं आता है तो we'll start from the very scratch. Just follow me, do your lab, और नोट्स बनाते जाओ जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ, तो यू विल डेफिनेटली बिकम अ चैंपियन, एंड आप थोड़ी भीड़ से अलग हो जाओगे, राइट. क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि दे नो बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों को पता होती है. उनके CV में अगर देखोगे तो वो 10-15 कीवर्ड्स को लिख रखे होते हैं कि भाई मेरे को SD-WAN भी आता है, Palo Alto भी आता है, राउटिंग स्विचिंग भी आता है. इट गुड कि आप बहुत सारी चीजें अपने रिज्यूमे में लिखो, लेकिन एक वो आपके लिए ना एक तरह से वो बहुत डेंजर बन जाता है. जिस टाइम पे आप अपने CV पे बहुत स्किल्स लिखते हो, तो देयर इज अ हाई चांस यू विल बी गेट एलिमिनेटेड एज वेल, यू विल गेट रिजेक्टेड एज वेल, राइट. तो कभी भी अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसको सबसे हाईलाइट करो. जो चीज नहीं पता है, देन यू जस्ट हैव टू राइट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखते हो तो जब आपका रिज्यूमे कोई पढ़ता है, देन ही नो लाइक यू हैविंग अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, सो ही विल नॉट जज इन लाइक डीपर साइड. बट बहुत लोग क्या करते हैं कि फेक कीवर्ड्स लिखते हैं, फेक नॉलेज लिखते हैं. इट गुड कि चलो ठीक है, जब हंटिंग कर रहे हो तो आप लिखो, एटलीस्ट ट्राई करो, अपने रिज्यूमे को सेलेक्ट कराओ ताकि आपका इंटरव्यू हो सके, ताकि आप 10 क्वेश्चन जान सको. इनिशियली ये अच्छा होता है, बट अगर आप एक सेटल्ड इंजीनियर हो, आपके पास जॉब है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू जस्ट गो इन द नेक्स्ट लेवल, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यू हैव टू हैव अपनी स्किल्स को पहले सीखो, उसके बारीकियों को समझो. यू बिकम फर्स्ट एक्सपर्ट ऑन दोस थिंग्स, देन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए जाओ आप. तो फिर उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है. अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ लिया गूगल से,
मैंने एक यूट्यूब से किसी की वीडियो देख लिया, दैट्स गुड, ये हमेशा करनी चाहिए, लेकिन उससे आपकी एक्सपर्टीज नहीं आती है, उससे आपका नॉलेज होता है यू हैविंग द फेमिलियरिटीज ऑफ द टेक्नोलॉजीज। मैं अगर बोलता हूँ कि मैं आज के डेट में मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर जैसे जैसे अभी बोलता हूँ कि जैसे मेटावर्स आ रहा है, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। जब मेरे से कोई मेटावर्स के टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा कि हाउ मेटावर्स वर्क, कैसे मशीन लर्निंग काम करती है, तो मैं सिर्फ टर्म जानता हूँ और बेसिक आइडिया जानता हूँ, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोस थिंग्स। सो समझेगा यार बंदा तो बेवकूफ बना रहा है। तो उसको अगर क्रैक करना है देन यू जस्ट हैव टू गो इन द नेक्स्ट लेवल। आपको छोटी 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 जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी हमारे सिलेबस के कंटेंट्स है, दैट यू ऑल हैव टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने का तरीका ये होता है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी को आप एक दिन में डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यू जस्ट हैव, जैसे आप योगा करते हो ना, जैसे अपने पोस्चर को सही करने के लिए, यू वांट टू बिकम वेरी स्मार्ट, वेरी गुड लुकिंग, तो आप क्या करते हो, अपने डाइट मेंटेन करते हो, यू आर डूइंग द एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस, आप उसके लिए आप टाइम निकालते हो, एंड देन योर posture is going to be changed, right? You are the like looking very nice, 10 लोग बीच में खड़े हो तो आप अलग ही देखोगे, यार बंदा स्मार्ट है, अच्छा लुकिंग है, अच्छा इसने फिजिक मेंटेन कर रखा। तो वो तो लोग देख रहे हैं, आप एक्टर एक्ट्रेस को देखते हो, यू ऑलवेज इम्प्रेस्ड कि हाउ दे आर गुड लुकिंग, राइट, और कितने अच्छा वो लोग पैसा कमा रहे हैं, बट यू डोंट नो कि उसके पीछे कितना सेक्रीफाइसेस वो लोग कर रहे हैं। वो छोले भटूरे नहीं खाते हैं जाकर, वो रसगुल्ले नहीं खाते हैं मार्केट में जाकर, वो महीनों सालों भर तक वो एक आइसक्रीम के लिए दे सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग। तो वो कितना उनका डेडिकेशन है, कितना ऑनेस्टी है, देन दे बिकम लाइक दिस वे। सो आप लोग को भी ये चीजें टेक्नोलॉजी जब सीखना है, देन यू जस्ट हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, छोटा छोटा स्टेप लेना है, नॉट गोइंग द हरी। आपको पहले एक ही सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, राइट। जैसे एक है ना हमारे पास कहावत, ईट स्लीप रिपीट, राइट, आप खाते हो, सोते हो, फिर उसको रिपीट करते हो, यही काम चलते रहते हैं। ऐसे ही आपको स्टडी करना है, फिर उसको लैब करना है, फिर से स्टडी करना है, फिर उसको लैब करना है, तो ये सारी प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है। जैसे आपने आर्किटेक्चर पढ़ा, दिस आर्किटेक्चर यू शुड डाइजेस्ट, कि मेरा अब डाइजेस्ट करने का तरीका क्या होता है, मैंने वीडियो देख लिया, मैंने पहली बार जब कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरे को 10% समझ में आता है, ट्रस्ट में, ओनली आई एम गोइंग टू डाइजेस्ट ओनली 10%। सो दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट। So आपका Firoz, you are saying you know screen and character are not visible. So I'm not writing anything. Just I have this screen, Firoz. You able to see the slide right now, Firoz? Can you confirm? Might be having an internet issue. Can you just check your side? Yeah. Disconnect and reconnect again if you are facing issues. Yeah, actually some character is not clear, not visual clearly. Some anyone having a such issue? Can someone confirm? No sir. नो तो फिर माइट भी आपका इंटरनेट का थोड़ा इश्यू होगा, थोड़ा स्लोनेस होगा, इसको भी हम ट्रबल शूट करेंगे आगे कि ये ऐसे इस नेटवर्क इंजीनियर ट्रबल शूट करते हैं कि आईएसपी में लेटेंसी चेक करो, पिंग करके देखो, ऐसे जाओ कमांड लाइन पे कंप्यूटर पे कि मेरे को कितनी लेटेंसी आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि नहीं। गेटवे एड्रेस होगा ना, तो आईपी कॉन्फिग यहाँ डालो एंड यू विल फाइंड द गेटवे एड्रेस, तो इसको पिंग करो एक बार, नहीं तो इसको अगर सही आ रहा तो आप 8.8 को पिंग करो आप एंड जस्ट पुट -t। तो देखो यहाँ पे कितना आपका ms सेकंड आ रहा है। अगर ये नॉर्मल आ रहा है 10, 20, 30, 50 तो ठीक है, अगर हायर आ दैट मींस यू हैविंग सम लेटेंसी इशू इन योर नेटवर्क, तो थोड़ा सा उसको आपको नेटवर्क जोन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए। तो आई वाज टॉकिंग कि टेक्नोलॉजी को जैसे हमें डाइजेस्ट करना है, तो हमें पहले 10% अगर समझ में आती है तो नो नीड टू वरी, इट्स ह्यूमन मेंटालिटी होता है कि बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं ऐसा, जो मैं नहीं हूँ, राइट, ट्रस्ट में, आई एम नॉट अ ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ चीजों को सीखने के लिए एंड आई होप कि आप लोग भी करते होगे। तो अगर आपको मैं एक बार में कोई चीज अगर सीखने की कोशिश करता हूँ तो नहीं समझ में आता है, देन आई विल गो रिपीट दैट, फिर मैं उसको नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं उसको वॉक करता हूँ, तो उसको मेमोराइज करता हूँ, रात में सोने से पहले उसके बारे में सोचता हूँ, प्रोजेक्ट को उसके बारे में सोचता हूँ, दैट्स बिकम माई हैबिट्स। तो जब इसको बार बार आप करते हो तो आपको एक बार ऐसा समय आएगा कि यू विल बी एक्सपर्ट ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक। You just have to do in this way कि आपको टेक्नोलॉजी को डाइजेस्ट करना है, तो पहले उसके टर्मिनोलॉजी को डाइजेस्ट करो। अगर आपको पालो अल्टो सीखना है तो जस्ट डाइजेस्ट कि पालो अल्टो में क्या कोर्स कंटेंट्स हैं। अच्छा, फाइल ब्लॉकिंग होता है, फाइल ब्लॉकिंग में क्या क्या हमारे पास है, ये वाइल्ड फायर का हमारा कुछ है, सिक्योरिटी प्रोफाइल है, कंटेंट आईडी में क्या हमारे पास, ये सारी चीजें पढ़ना है, ऐप आईडी क्या होता है, ये होता है। फिर ऐप आईडी का मतलब समझो, कंटेंट आईडी का मतलब समझो, डिक्रिप्शन का मतलब समझो, पहले आप सिलेबस को समझो, देन you'll have the understanding of this particular topic। जब आप
कंटेंट ही नहीं समझ पाओगे तो इसके कंटेंट का अंदर का क्या चीज समझ पाओगे, राइट? तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो पढ़ने का तरीका है, देन यू जस्ट हैव टू डेवलप इन दिस वे, राइट? सो मूविंग फर्दर, राइट? कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई सजेशन, कोई फीडबैक टिल हियर, और shall we move next stage? Okay, so I hope all good till now. So moving next, right? Pankaj sir, one question here. When you are pinging the 8.8.8.8, TTL value is the 117. So this is the Linux, this is the window. Which one is this? This is the window machine. Default TTL 117 window it's showing always. Okay. ठीक है? So ये window का ही है. Okay, okay. So now let's start with our topic. So Okay. one question I'm having. Yes, शेख बताइए. आज आप लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि ये सेक्शन मैंने सिर्फ ज्यादा मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ. इट्स मोर अबाउट द ओपन सेशन. के जितने भी डाउट्स है ना, यू गाइस शुड बी क्लियर विद मी डायरेक्टली, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन. यस शेख बताइए आप. So one interviewer asked me about the stateful, right? Stateful firewall maintains a state table and connection table. Right. So what he asked me in that, what firewall what exactly in the content table, state table, and what exactly in the connection table? What exactly in connection table, right? Yeah. Yes. So definitely you will get this answer in the upcoming session जब इसको हम बात करेंगे. बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जब आप सेशन टेबल देखते हो, राइट नाउ आई डोंट हैव दिस सेशन टेबल बिकॉज हमने लाइव अभी ओपन नहीं किया है, बट लेट मी शो यू. मैं बता रहा हूँ, जब आप सेशन टेबल जस्ट गूगल पे जाओ आप, पालो अल्टो, मैं दिखाना चाहता हूँ, बताने को तो बता दूंगा, लेकिन जस्ट यू सी दैट कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है. सेशन टेबल CLI, ठीक है? सो जस्ट I wanted to show you. See, this is a session table. आप यहाँ देखो. So इस session table के अंदर ये भी थोड़ा सा जो मेरे को चाहिए वो नहीं है. Let me see. हाँ ये वाला शायद. I told him about the session table, like it's a source IP, source port, destination IP, and destination port. Like I said, like. Then what they said? They not agree with that? Yeah, he agreed on that. Then he told me, what about the connection table? So connection table. See, connect. There is no any connection table. That is a session table only in the Palo Alto Firewall. The session table they might be referring as a connection table, but only we have the table that is a session table, right? That firewall is known as the state full firewall, and that maintain the state. So you can understand that it's a session table or it's a connection table. The meaning should be the same. It's not like a connection table कुछ अलग से नहीं होता है, हमारा सेम ही होता है. तो समझने का तरीका, जैसे आपने बिल्कुल करेक्टली सही बताया, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. जैसे आपके पास सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, आपकी NAT की इंफॉर्मेशन होती है, आपका एक कनेक्शन ID होता है, जो कनेक्शन ID सेशन ID सेम होता है, राइट? तो वो कनेक्शन ID है, सेशन ID, जैसे ये सेशन का ID एक बना हुआ है, देखो सेशन ID देखो दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है दिस इज सेशन ID. तो ये सेशन ID होता है. इसके अंदर देखोगे आप, देखो यहाँ पे TCP पोर्ट है, ये सोर्स पोर्ट रैंडम होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 80 है 443 के लिए. सो सोर्स डेस्टिनेशन IP आपको दिख रहा है, जोन भी दिख रहा है आपको यहाँ पे. दिस ऑल इन्फॉर्मेशन विल डेफिनेटली डीप डाइव, जब मैं NAT कराऊंगा, सेशन टेबल बताऊंगा, तो एक एक चीज को हम समझेंगे. बट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपने जो बताया. I also same like this, but he crossed me about the came again on that the connection table. So I told him to, so I don't know. He basically sometime interviewer just used to confuse you, right? So there is no connection table in separate in the Palo Alto. That's a session table only we have. Okay. Right? So ऐसा कुछ हमारे पास लॉजिक नहीं होता है कनेक्शन टेबल. अच्छा चलो, अगर मान लेते हैं कि someone is going to give the interview, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ. जैसे आप लोग might be, ऐसा मत जज करना कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मतलब कि just I want to take the test through someone, या मैं ऐसा कुछ प्रूव करना चाहता हूँ. बट आप लोग से पूछता हूँ, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि what is the difference between the route based VPN and policy based VPN? So हम इसमें एक कोर्स में करने वाले हैं, राइट? बट someone is going to ask, जैसे साइड टू साइड VPN हमारी बात होती है, तो इसके अंदर हमारे पास Palo Alto के हमारे पास जब भी बात करते हैं, तो ये Palo Alto Firewall भी ये दोनों सपोर्ट करता है. तो हमारे पास एक आता है राउट बेस्ड VPN वर्सेस पॉलिसी बेस्ड VPN.
So anyone having this idea कि मतलब कि अगर कोई पूछ दे आप लोग से, तो कुछ लोग पुराने भी होंगे, किसी लोग को आइडिया भी होगा. As per my knowledge, route based is the packet filtering and policy based is used for like application based, I think so. Good, चलो एटलीस्ट आपने ट्राई किया and appreciated. Anyone else having this idea? What is the route based VPN? What is the policy based VPN? कभी किसी ने नाम सुना है किसी कोर्स में? कभी आप लोगों ने कभी कभी कॉन्फ़िगर किया हो, कभी देखा हो? Route based support like it will not support like this EIGRP and OSPF. Route based. No, policy based will not support this, whereas route based will support. अच्छा, route based will support the EIGRP and dynamic routing will route based support, right? Yeah. Okay, let me just write it. Dynamic routing. Okay, policy based will not. That's a good point. I noted it. Anyone also know anything about? Just feel comfortable. कुछ भी गलत सही बताओ. मेरा काम है आप लोगों को ट्रेन करना, बताना. जस्ट आई एम गिविंग द लाइक बहुत ही फैंसी सा क्वेश्चन है. बहुत कुछ पैट सा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे पूछा था कि स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ये बहुत सारे क्वेश्चन है. SP3 आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाता है, राइट? आपसे पूछा जाता है नेट के बारे में पूछा जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू कवर बट विल डिस्कस सम स्मॉल पॉइंट इन टुडे सेशन, ताकि जो आप लोगों का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो समझ में आए कि हमें आगे करना क्या है. उससे जैसे होता है ना कि जैसे कुछ स्टार्ट बड़ा करने से पहले उसका हम पहले एक तरह से टेलर देखते हैं, तो इस तरीके का मैं आपको चीजें थोड़ा सा आज ओवरव्यू देना चाहता हूँ. चलो मैं बताता हूँ. देखो, मैं इसको कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि इसको करके मैं लैब में दिखाऊंगा. जब आप लोग अभी नहीं, जब हम लोग साइड टू साइड VPN पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे, राउट बेस्ड VPN वर्सेस पॉलिसी बेस्ड VPN. बट कभी भी आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मेरे को पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं श्योर हूं कि हमारी इस पर्टिकुलर लेक्चर में मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग द सिस्को CCNP और CCNA लेवल ऑफ नॉलेज. अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है. फायरवॉल में आपको अगर CCNA लेवल की नॉलेज नहीं है एंड यू स्टिल वांट टू लर्न द फायरवॉल, तो बेसिक नेटवर्किंग अगर आती है देन यू कैन डू. बट मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ लोग CCIE लेवल की भी नॉलेज होगा. एंड यू गाइज हैविंग आल्सो नॉलेज सम काइंड ऑफ द IPsec टनल कॉन्फ़िगरेशन. आप लोगों ने सिस्को के डब्बे में जरूर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने किया होगा सिस्को. लेकिन कभी किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन राउटर में करते हैं और फायरवॉल में करते हैं IPsec टनल बनाने के लिए, वो मेरा राउट बेस होता है VPN या पॉलिसी बेस होता है. कभी हमने ये चीज सोचा नहीं है, क्योंकि हम इतना तक ज्यादा हम डीप में सोचते ही नहीं है. एंड देन क्वेश्चन कम टू द इंटरव्यू कि भाई आप तो IPsec रोज करते हो, कौन सा IPsec करते हो? दैट्स राउट बेस्ड VPN और पॉलिसी बेस्ड VPN, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टू टर्मिनोलॉजी, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है. जैसे आई थिंक गौरव जी ने एक आंसर दिया एंड सेकंड वन इज लाइक हु गिवन द आंसर्स, राहुल एंड एक किसी चंदन ने दिया था एक, राइट? तो दे वर एब्सोल्युटली राइट. बट कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर मैं पॉलिसी बेस्ड VPN की बात करता हूं, तो पॉलिसी बेस्ड VPN जब भी आपकी बनती है, कभी भी पॉलिसी बेस्ड VPN बनाओगे तो उसकी सेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक स्लाइटर डिफरेंस देन द राउट बेस्ड VPN. जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन तो मैं बताता हूँ. देखो, IPsec जब भी आप करेंगे तो उसमें दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है. एक आप टनल के थ्रू IPsec बनाते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाकर पॉलिसी जस्ट आप लोगों को बेस्ड VPN कॉन्फ़िगरेशन सिस्को राउटर पे जाता हूँ. कहीं तो मिल जा, और ना मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. इधर सिंपल मिल जा. देखो, सो लेट मी सी पेज 1 पे. हाँ देखो यहाँ पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलिसी बेस्ड VPN. दिस इज एग्जांपल ऑफ द पॉलिसी. देखो IPsec ही हमने बनाया है, VPN ही बनाया है. बट वाई दिस इज द पॉलिसी बेस्ड VPN? कि जब भी आप पॉलिसी बेस्ड VPN की बात करते हो, तो उसके अंदर ना आप जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक होता है उसको हमेशा आप मैच करते हो अंडर द एक्सेस लिस्ट. जो हम आगे डिस्कशन करेंगे हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, बट
जस्ट गिविंग एग्जांपल कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो जिस वीपीएन के अंदर आपका एक्सेस लिस्ट कॉल हो ट्रांसफॉर्म सेट या क्रिप्टो मैप के अंदर, देखो ये फेज 1 हो गया है, फेज 2 पैरामीटर्स हो गए। अगर आप क्रिप्टो मैप बनाते हो और उसके अंदर आपका एक्सेस लिस्ट मैच किया हुआ है, मतलब आपने ट्रैफिक को मैच करने के बाद देन यू आर अप्लाइंग टू कि उसको पास होना है कि नहीं होना है, जहां पे आप फिल्टरिंग करते हो, जहां पे आप उसको मैच करते हो कंडीशन की, वो आपका पॉलिसी बेस्ड वीपीएन बन जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मतलब फेज 1 फेज 2 आईपीसी के कन्फिगर करते हो एंड देन यू जस्ट गोइंग टू क्रिएट द क्रिप्टो और उसके अंदर आप एसीएल बनाकर उसको आप कॉल करने की कोशिश करते हो, दैट्स बिकम ऑलवेज पॉलिसी बेस्ड वीपीएन। बट अगर आप राउट वीपीएन की बात करते हो तो इसमें ये एसीएल की जरूरत नहीं होती है, आपकी राउटिंग चेक होती है हमेशा। इट इज गोइंग टू चेक द राउटिंग्स, राउटिंग टेबल, जिसके अंदर आपका बेसिकली डायनेमिक राउटिंग, जैसे विल गेट द वन आंसर की डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करता है, तो ऑल डायनेमिक राउटिंग इज गोइंग टू हैपन। और उसके अंदर हम टनल बनाते हैं, जो भी टनल के थ्रू आप जीआरयू और आईपीसी बनाते हो ना, तो वो वाले जो वीपीएन होते हैं दैट ऑलवेज बिकम, जिसके अंदर हम राउट बेस, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आते रहे। सो you'll get that somewhere in the configuration, let me see. कहाँ पे कहीं तो मिल जाओ सैंपल कॉन्फ़िगरेशन। Let me see. So this is your policy based VPN example. See, sorry, route based. इसके अंदर देखो access list नहीं है. You just using the tunnel source and destination, and you just applying the protection via the IPsec tunnel. अगेन इसमें फेज 1 भी है, फेज 2 पैरामीटर्स भी है, आप ट्रांसफॉर्म सेट भी बना रहे हो, लेकिन इसमें कोई एसीएल आप नहीं कॉल कर रहे हो। मतलब आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को आप एसीएल्स के बेसिस पे नहीं अलाउ कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो। यू आर टोटली पासिंग ऑल द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द राउटिंग्स। सो जहां पे एक टनल की कॉन्फ़िगरेशन और टनल पे डायनेमिक राउटिंग चलाना चाहते हो, बहुत ही इजी वे टू अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड राउट बेस्ड वीपीएन डिफरेंस क्या होता है। बहुत इजी ये है। कई लोग कितनी थ्योरी पढ़ लेते हैं बट दे नेवर गेट द आंसर कि आंसर है कहां पे। बट आंसर इज दिस कि कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका है दैट इज ओनली डिफाइनिंग द पॉलिसी एंड राउट बेस्ड वीपीएन डिफरेंसेस। कि अगर आपको टनल बनाना है, टनल के ऊपर राउटिंग चलानी है, देन यू आर जस्ट पासिंग द ट्रैफिक थ्रू द राउट, दैट्स बिकम द राउट बेस्ड वीपीएन। पॉलिसी मींस कि यू जस्ट मैचिंग द ट्रैफिक इन द एक्सेस लिस्ट एंड देन यू आर पासिंग द ट्रैफिक। सो उस पे आपको डायनेमिक राउटिंग नहीं चलता है। डायनेमिक राउटिंग ऑलवेज वर्क ऑन द राउट बेस्ड वीपीएन। इसीलिए Palo Alto always support the route based VPN। मतलब बाय डिफॉल्ट Palo Alto Firewall route based VPN सपोर्ट करता है। बट स्टिल अगर आपको एक तरफ Palo Alto रखना है, एक तरफ Cisco का राउटर रखना है, अगर आपको एक तरफ राउट बेस्ड VPN करना है, एक तरफ पॉलिसी VPN करना है, स्टिल दे आर गोइंग टू क्रिएट द टनल्स। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, इंटरऑपरेटेबिलिटी है, बट बाय डिफॉल्ट आपका Palo Alto राउट बेस्ड VPN ही सपोर्ट करता है। ठीक है। सो हबीबुल ने बताया है कि पॉलिसी बेस्ड VPN डजंट सपोर्ट हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट हबीबुल, कि ये सपोर्ट नहीं करता है। ये आपका राउट बेस्ड VPN ही सपोर्ट करता है। पॉलिसी बेस्ड VPN हमेशा लीनियर टोपोलॉजी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की बात करता है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा टर्मिनोलॉजी, बस यू गाइस शुड नो। कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग, मैं आगे आप लोग को इस बारे में बताऊंगा और डिटेल जब हम साइड साइड VPN करेंगे। बट आई जस्ट वांटेड टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू यू ऑल। Sir, that means with the help of ACL packet filtering, with the help of ACL, we are doing the packet filtering. Right. Okay. राइट। अब ये बातें ना लोगों को समझ नहीं आती कि पैकेट फिल्टरिंग का मतलब क्या है। बाय द हेल्प ऑफ द यूजिंग ACL, we are doing the packet filtering. So when one link is down and second link need to be transferred the traffic, so I need to create the ACL or change the ACL in the data center router. I have done this before a 6 year actually. I just forget this the ACL topic. कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोग को रिमाइंड कराना, क्योंकि जब when we'll discuss this entire IPsec configuration, we'll go via the CCIE book. So हम जितने IPsec के फंडामेंटल्स हैं that will cover from here। कि जो हमारे ENCOR ENARSI के जो हमारे CCIE के बुक है, तो कंप्लीट जो थ्योरी पार्ट है विल डिस्कस फ्रॉम फेज 1 फेज 2, जितने पैरामीटर्स हैं विल डिस्कस फ्रॉम दिस बुक। सो आप लोगों को पूरा डीप टाइप अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हमारा फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, और कैसे हमारा IPsec टनल बनती है। तो विल गेट वेरी डिटेल गुड अंडरस्टैंडिंग। GRE क्या होता है, IPsec क्या होता है, सो ऑल विल गेट फ्रॉम हियर। ओके,
IPsec फंडामेंटल, तो उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को पूरी। प्रीतम इज आस्किंग लोड बैलेंसिंग एंड रिडंडेंसी किस मॉड्यूल में है? सो लोड बैलेंसिंग एंड रिडंडेंसी दो अलग अलग चीजें हैं प्रीतम। सो दैट इज नॉट, वी आर नॉट डूइंग द राउटिंग्स। सो बेसिकली लोड बैलेंसिंग एंड जो हमारा रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है वो हम राउटिंग बात करते हैं, बट हमारे पास अभी दो मॉड्यूल आपने शायद किया होगा, तो हमारे पास रिडंडेंसी की जब बात करते हैं, सो वी हैव द एक्टिव पैसिव फायरवॉल्स। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा ये पीसी इंटरनेट से बात कर रहा है, राइट, इट्स गोइंग टू द इंटरनेट, राइट, इट्स गोइंग टू द इंटरनेट, when this firewall goes down my traffic should move to another firewall, this is become the redundancy. So ये इस मॉड्यूल में आपको कवर होगा कि redundancy इसमें आपका यहाँ पे काम आए। अब बात करते हैं लोड बैलेंसिंग क्या होता है। तो हमारे पास दूसरा इसी का एग्जांपल है कि लोड बैलेंसिंग का जो हमारे फायरवॉल में एग्जांपल होता है उसका हमारा एक्टिव का ही हमारे पास, सॉरी एक्टिव पैसिव का ही हमारा दूसरा एक ब्रदर है, उसको बोलते हैं एक्टिव HA का पार्ट है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोड बैलेंसिंग करते हैं या लोड शेयरिंग हम बोल सकते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो इसके अंदर एक पीसी का ट्रैफिक इस फायरवॉल से जाएगा, दूसरे पीसी का ट्रैफिक इस फायरवॉल से जाएगा। सो दिस इज द लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। सो दिस इज द एक्टिव सिनेरियो जहां पे यूज करेंगे। तो प्रीतम क्लियर टू यू कि आप जो पूछ रहे हो कि हम एक ही फायरवॉल से नहीं कर सकते क्या लोड बैलेंसिंग? एक फायरवॉल से आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, आप एक फायरवॉल से लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, बट रिडंडेंसी आपको नहीं मिलेगी। आप राउटिंग बेस पर लोड बैलेंसिंग कर सकते हो एक फाइल पर दो लिंक लगाकर। मैं इसलिए पहला सेंटेंस यही था कि लोड बैलेंसिंग ऑलवेज एंड लोड रिडंडेंसी ऑलवेज यूज इन द राउटिंग टेबल्स टू जस्ट मेक द लोड बैलेंस बिटवीन द टू लिंक्स। अगर एक ही डिवाइस पर दो लिंक्स आ रही हैं, बीजीपी चला रहे हो, तो यू कैन स्टिल डू द लोड बैलेंसिंग, बट उस केस में आपका रिडंडेंसी नहीं होगा। अगर फायरवॉल डाउन तो दोनों ही आपको लोड बैलेंसिंग डाउन खत्म हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन दूसरा है, फायरवॉल के बाद दो ISP है, उसके लिए मुझे लोड बैलेंसिंग या रिडंडेंसी करना। एक मिनट मैं आपको आंसर देता हूँ, एक मिनट बस, एक बार चंदन का क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। इन FortiGate हैविंग द PB, हाँ यस चंदन यू आर राइट। हाँ आप क्या पूछ रहे हो कि आपका, एक सेकंड मैं आपका टोपोलॉजी में ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज योर Palo Alto Firewall, ठीक है। इसके पीछे आपका LAN है जहाँ पे आप या आपके ऑफिस के कलीग बैठे हुए हैं। देन यू आर अलग सबनेट में ऊपर दो ISP है। हाँ एक मिनट आपकी टोपोलॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द फायरवॉल, दिस इज द PA फायरवॉल PA01, ठीक है। ये ISP मान के चलो कि दिस इज द AT&T, राइट, एंड दिस इज योर ISP इज द Verizon, राइट। नाउ आस्क मी योर क्वेश्चन कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो एक ही साथ तो लोड बैलेंस भी उतरे, अगर कोई ISP डाउन हो तो सारा ट्रैफिक उस साइड मुड़ जाए। हाँ वी कैन डू एब्सोल्युटली वी कैन डू। देखो बहुत आसान है। यहाँ पे Palo Alto Firewall always support the BGP। जो हम configuration करेंगे will do how the BGP is going to configure। so यहाँ पे आप eBGP चला लो, let me just write here, eBGP चला लो यहाँ भी eBGP चला लो, ठीक है। so now you are going to get, suppose मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ये आपका ISP है, एक डिफॉल्ट राउट दे रहा होगा, राइट। so ये डिफॉल्ट राउट मान के चलो कि ये एक डिफॉल्ट राउट दे रहा है, ये 0 का, ये भी एक डिफॉल्ट राउट दे रहा है आपको। तो आपके इस पर्टिकुलर फायरवॉल पे 2 कॉपी ऑफ डिफॉल्ट राउट यू आर गोइंग टू गेट, 2 कॉपी ऑफ डिफॉल्ट राउट यू आर गोइंग टू गेट ऑन दिस पर्टिकुलर फायरवॉल। एक यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा, बट विच वन इज गोइंग टू इंस्टॉल इन द फिब टेबल? रिब टेबल में दोनों ही आएंगे ना। सो वी हैविंग अ रिब टेबल, रिब इज द राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड टेबल। सो रिब टेबल में आपके पास ये भी आएगा 0.0 वाया R1, राइट। दूसरा क्या आएगा आपके पास 0.0.0/0 via R2, but which one is going to install in the fib table, forwarding information based table? दोनों राउट तो होंगे नहीं fib table में इंस्टॉल। rib table is collection of the all possible route, but fib table is just going to install the best route. So BGP path selection come in a picture. So fib table में BGP path selection process is going to come in a picture. It's out of syllabus, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों को नहीं पता होगा, तो don't be confused. This is CCIE and CCNP NRC course. So BGP
सिलेक्शन पाथ जो हमारा होता है, पाथ सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे वेट होता है हमारे पास, लोकली ओरिजिनेटेड होता है, लाइक नेक्स्ट reachability is the first attribute. फर्स्ट नेक्स्ट होप रिचुअल हमारा होता है पहला, फिर हमारे पास वेट होता है, फिर हमारे पास लोकली ओरिजिनेटेड होता है, फिर हमारे पास एएस पाथ होता है, फिर हमारे पास एमएडी होता है, फिर हमारे पास ईबीजीबी वर्सेस आईबीजीबी होता है, फिर हमारे पास इसके बाद एएस पाथ मैंने बता ही दिया, एंड देन यू फाइंड द मोर 2 3 एंड देन फाइनली इट इज गोइंग टू टाई ब्रेक ऑन द आपका जो लोएस्ट राउटर आईडी होता है। तो अगर मेरा इसका lowest physical router ID, मतलब राउटर आईडी अगर नहीं कॉन्फ़िगर तो फिजिकल आईपी इंटरफेस इज अ टाई ब्रेकर। okay, फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस अगर राउटर आईडी नहीं कॉन्फ़िगर है तो सो yes, अगर मान के चलो कि ये वाला राउटर का आपका फिजिकल आईपी जो लोअर है, तो ये आपका हमेशा ट्रैफिक आएगा यहाँ से इधर चला जाएगा इंटरनेट पे। बट व्हेन दिस राउटर गोज डाउन, दिस लिंक गोज डाउन, दिस लिंक गोज डाउन, सो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रैफिक जाने लगे, क्योंकि इसके फिब टेबल में अब आपके पास R2 वाला ही बचेगा, ये तो हट गया होगा। सो इस तरीके से लोड बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये चेंज हो रहा है कि फायरवॉल के नीचे 2 अलग अलग नेटवर्क सबनेटिंग है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सीनियर जो लोग हैं वो 100 Mbps वाला यूज करें R1 से, और जूनियर वो R2 से जो 50 Mbps वाला यूज करे साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ। चलो आज आपका सारा ही चला लेते हैं। चलो आपका एक सीनियर इंजीनियर है, आई लव द क्वेश्चंस बेसिकली, आई अप्रिशिएट। बताओ सबनेट बताओ इसका 192.168.10/24 राइट, और आपका जूनियर इंजीनियर का ले लेते हैं राइट, इसका ले लेते हैं 10.10. ये चलो 172.16.10.0/24, यही 2 सबनेट है, ठीक है। अब बताओ किसको किसे चलाना है। गजानंद 1 मिनट वेट करो, मैं आपको सीनियर को R1 से चलाना, जूनियर को R2 से चलाना है एक के साथ। तो कोई अगर डाउन होता है तो सभी एक दूसरे साइड मूव हो जाए। एक सेकंड आप चाहते हो कि ये ट्रैफिक आपका, मैं कलर यूज करता हूँ अलग, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा ना मेरी मेमोरी कमजोर है तो मैं हमेशा ड्राइंग करके बनाता हूँ। सो यहाँ से आप चाहते हो कि ये सीनियर इंजीनियर का ट्रैफिक जाए यहाँ से, ऐसा ठीक है, ये चाहते हैं आप प्रीतम? हेलो जी। और जूनियर इंजीनियर का ट्रैफिक आप चाहते हो कि यहाँ से जाए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है लेकिन क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आपको। अब सीनियर इंजीनियर जो ट्रैफिक आप इस लिंक से ले जाना चाहते हो, तो मैं जान सकता हूँ कि वो क्या डेस्टिनेशन एक्सेस करना चाहता है, किस तरीके से आप ले जाना चाहते हो, ये सीनियर इंजीनियर क्या डेस्टिनेशन एक्सेस करना चाहता है? क्या डेस्टिनेशन मतलब कि वो चाहता है कि उसका नेट कभी स्लो ना हो। अब देखो, मैं सुनो आप समझो बात को, मैं क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल हो जाएगा अगर क्रॉस क्वेश्चन हो गया तो। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ कि देखो इस सीनियर इंजीनियर को भी आपको गूगल एक्सेस करना पड़ सकता है, ठीक है, और जूनियर इंजीनियर को भी गूगल एक्सेस करना पड़ सकता है। बराबर है, सबको सब कुछ यूज करना है, लेकिन स्पीड का फर्क है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सीनियर, मैं समझ गया, लेकिन डेस्टिनेशन तो गूगल ही एक्सेस करेंगे ना दोनों के दोनों। आप चाहते हो कि ये मेरा ट्रैफिक आए तो मेरा इस लिंक से जाए, मतलब जूनियर वाला इधर से जाए, सीनियर इधर से जाए, लेकिन दोनों गूगल पे ही ट्रैफिक जाना है, राइट? यू वांट, देखो पहले बात, नॉर्मल राउटिंग सिनेरियो में अगेन आई एम रिपीटिंग द नॉर्मल राउटिंग सिनेरियो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। need to be use SD-WAN and need to be auto failover। हाँ, ये नॉर्मल राउटिंग सिनेरियो में नहीं पॉसिबल है। अगर एक डेस्टिनेशन को अगर दो, क्योंकि राउटिंग ऑलवेज हैपन बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सो गूगल का एक फिक्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस या तो इस फायरवॉल में इस लिंक से इंस्टॉल होगा या तो इस लिंक से इंस्टॉल होगा, दोनों से नहीं होगा राउटिंग टेबल में। Can I configure AD value 10 for AT&T or 20 for the Verizon to do the failure between the 2 ISP? Definitely we can definitely do the failover based on the AD value, but still I'm saying अगर आपने AD value अगर 10 कर दिया इसके लिए, 20 कर दिया इसके लिए, but still the route is going to install in the fib table, single route is going to install। अगर AT&T से install होगा तो all traffic based on the junior and senior they always go by this। इस पे तब आएगा जब ये down होगा, तब आएगा। You got my point। So कुछ भी attribute लगा लो, at a time one routing table having the one route for the any destination। You guys getting me? Yes। प्रीतम यहाँ तक agree आप कर रहे हो? सब लोग agree कर रहे हैं? तो normal routing scenario में this is not possible to do the load balancing।
ठीक है, अब बात आती है इसको कैसे करेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम वाज हैपनिंग इन द लेगेसी नेटवर्क, इसीलिए हमारे पास SD-WAN का सॉल्यूशन आया। सो इफ यू आर यूजिंग द SD-WAN सॉल्यूशन, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। या अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते हो, अगर इसको भी नहीं करना चाहते हो, सो आप चाहते हो कि SD-WAN भी ना यूज करो, तो थर्ड सॉल्यूशन वी हैव इज द PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। आई वांटेड समवन ऐड, बट कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसके बिहाफ पे हम ये जो बोल रहे हो ना, एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप PBR यूज करोगे तो आप बिना SD-WAN का भी ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि PBR ऑलवेज सप्रेस द राउटिंग टेबल। वो कभी राउटिंग टेबल PBR कॉन्फ़िगर कर दिया तो राउटिंग टेबल चेक ही नहीं होता सोर्स डेस्टिनेशन के लिए, वो हमेशा बाईपास करता राउटिंग टेबल को। PBR अगर कॉन्फ़िगर करते हो आप किसी भी डिवाइस पे, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बाईपास योर राउटिंग टेबल्स, इट इज नेवर गोइंग टू चेक द राउटिंग टेबल्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द PBR। तो PBR हम फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करेंगे क्या? Yes, we having the PBR options also on the fiber. Policy based routing we have in the firewalls. आप जो बोल रहे हो, if you want to achieve, it is absolutely possible in the PBR. PBR router भी सपोर्ट करता है और firewall भी सपोर्ट करता है, अगर आपको करना है तो। If you having this requirement, we can do कोई that. डिसएडवांटेज PBR का? कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कर सकते हो आप। PBR फीचर ही है, राउटर यूज होता है, और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। When you use the PBR ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि PBR मतलब दैट इज समथिंग कि मतलब कि कई लोगों को समझ ही नहीं आता है कि PBR चल कैसे रहा है। कई लोग ये भी नहीं पता होता है कि राउटिंग मेरे पास है और हमने PBR लगा दिया तो कैसे होता है। तो मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, जस्ट इफ यू थिंकिंग कि मैं कुछ बता रहा हूँ, जस्ट मेक योर माइंड कि अगर आपने PBR चला दिया, राउटिंग टेबल में क्या राउट रखा हुआ है, इट इज नेवर गोइंग टू चेक। PBR is just going to bypass everything and always going to check the PBR। मतलब उसने क्या देखा कि मेरा जूनियर इंजीनियर का IP ये है, ठीक है, देखो बताता हूँ, पैकेट लिख के बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे इफ यू हैविंग दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जस्ट थिंक अबाउट, जूनियर इंजीनियर का पैकेट आपका है 172.10.10.10। इसको गूगल पे जाना, जैसे मान के चलो इसकी IP है 23.23.45.2.2। सो अगर आपके राउटिंग टेबल में, फिब टेबल के अंदर बात कर रहा हूँ, इसमें आपका एक राउट इंस्टॉल है, जस्ट थिंक अबाउट इट, 23.45.2.2 वाया R1। मतलब राउटिंग टेबल ये बोल रहा है कि अगर आप फायरवॉल से जाना चाहते हो इस पे, तो आप इस लिंक के थ्रू जाओगे। ये राउटिंग टेबल आपको बोल रहा है, दिस लिंक इज गोइंग टू ऑन द फायरवॉल, ये राउटिंग टेबल आपको बोल रहा है। बट मैं क्या करूंगा, एक PBR बनाऊंगा, एक मैं यहाँ PBR की एंट्री लिखूंगा, PBR के इसमें बोलूंगा when you match the source that is a 172.16.10.10 and destination IP आप 23.45.2.2 set next hop via R2। तो जैसे ही मैं एंट्री डालूंगा, अब इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये तो मैं जस्ट सैंपल बता रहा हूँ, इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, PBR कॉन्फ़िगरेशन होती है, राउट में पॉलिसी में। राज यू देयर, मिस्टर राज फ्रॉम USA? राज इनका yes sir I am here। ओके, राज में बैठा है, संदीप सर आप। राज, यू गेटिंग मी? आपने पूछा था ना PBR का, यू ट्राई टू डू दिस लैब, जो उस दिन बात हुई थी लास्ट क्लास में इनकोर में। जी अभी तक नहीं किया, मैंने सेटअप कर रहा था। हाँ, तो इसमें हम PBR में सोर्स एंड डेस्टिनेशन में डिफाइन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट? Once we define the source and destination IP address and we set the next hop IP address, this going to change your game. This routing will never going to be checked. It is always going to bypass and PBR will come in a picture. जैसे ही इसका पैकेट यहाँ फायरवॉल पाएगा, it is just going to forward this packet via this link. यहाँ पे जाएगा ही नहीं। प्रीतम, all three possible solution I told you, इसके अलावा कोई solution नहीं अच्छा होता मेरे नॉलेज में अभी तक। VLAN के थ्रू नहीं कर सकते? वाटिफ अगर क्या होगा, अगर राउटर 2 डाउन होगा तो फिर रिडंडेंसी हो जाएगी उस कंडीशन में। राउटर 2 डाउन होगा तो फिर आप कर सकते हो, बट स्टिल अब इसके अंदर आपको अगला कॉन्सेप्ट, चलो मैं बताता हूँ, IPSLA के थ्रू ट्रैक करना पड़ेगा, then it is going to be down and then it is going to check the normal routing, तब फेलओवर होगा। ठीक है सर, VLAN के थ्रू कर सकते हैं इसको? हाँ, VLAN के थ्रू भी कर सकते हो आप, VLAN के ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा,
विलन के थ्रू भी आप कर सकते हो। विलन आप बनाते हो तो पीबीआर विलन पे लगा दो इंटरफेस की जगह, वहां भी चल जाएगा आपका। नहीं इस सर इसी नॉर्मल सिनेरियो में जैसे लेन में जितने कस्टमर चल रहे हैं, जितने पीसी लगे हैं वो एक विलेन में डाल दें, और अलग जो सीनियर इंजीनियर्स की पीसी है उनको अलग विलेन में डाल दें, और विलेन को फायरवॉल से कनेक्टिविटी करके फिर उसका ट्रैफिक अलग R1 से चला जाए, उसका ट्रैफिक R2 से चला जाए। तो विलेन बेस पे नहीं कर सकते इसको स्विच कॉन्सेप्ट? सर HSRP यूज कर सकते हैं। चलो मैं एक एक करके सबका लिख लेता हूँ, मैं एक एक करके Sir, आंसर। one more thing. One more. Can you please little bit explain me about this, because I am unable to understand that you mentioned that PBR source destination IP and said next hop via R2. Can you please explain? हाँ मैं एक just give me some time. Let me just write something. So one is the can we do via VLAN, right? This was one thing. Second one was like can we do via HSRP? And third one was like need to explain, right? ये क्या है PBR? ये तीन चीजें, right? So चलो मैं PBR को थोड़ा सा रिकैप करता हूँ ताकि सेक विल आल्सो अंडरस्टैंड, राइट? PBR, so PBR देखो, PBR एक टेक्नोलॉजीज है। जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल में आप EIGRP पढ़ते हो, OSPF पढ़ते हो, BGP पढ़ते हो, तो PBR इज अगेन वन टेक्नोलॉजी इन द सिस्को डोमेन, और बिना सिस्को डोमेन की बात करो उसमें भी यूज होता है। सो PBR का काम ये होता है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बोलते हैं इसको। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में ये होता है कि इफ यू वांट टू बाईपास योर राउटिंग टेबल, इफ यू वांट टू बाईपास योर राउटिंग टेबल, मतलब आपको राउटिंग टेबल चेक नहीं करना है, यू कैन यूज द PBR। PBR क्या करता है कि इसमें जैसे ही आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस मैच होते हैं, आप जहां इसको भेजना चाहते हो, जिस नेक्स्ट होप पे, जिस डिवाइस पे इसको भेजना चाहते हो, जिस IP पे भेजना चाहते हो, पैकेट आपको उधर स्विच हो जाता है। सिंपल इसका मतलब ये होता है Okay. PBR का। you'll get the more depth knowledge with the lab। जब इसको CCNP ENCOR NRC करोगे तो you'll get the more in depth, because सिलेबस का पार्ट है। तो PBR is very important। अगर आप एक अच्छा इंजीनियर हो, you should know the PBR, ठीक है? Now the second question was, can we do via the VLANs? So actually Mr. Khan, you were right कि हम दो विलन बना लेते हैं। जैसे विलन हमने बना लिया यहाँ पे 10 और विलन बना दिया 20, बट आप विलन से आप यूजर के सबनेट को सेग्रीगेट कर रहे हो। सो मैं बता रहा हूं कि जो राउटिंग होती है, तो विलन के जो आपके यूजर्स के IP होंगे, यूजर्स IP, दैट्स नोन एज द सोर्स IP एड्रेस। सोर्स IP एड्रेस, दिस इज द सोर्स IP एड्रेस। बट दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन IP। एप्लीकेशन IP मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन IP एड्रेस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, राउटिंग ऑलवेज हैपन ऑन द डेस्टिनेशन IP एड्रेस। कभी भी राउटिंग सोर्स पे नहीं होती है। राउटिंग नेवर चेक द सोर्स एड्रेस, इट ऑलवेज चेक द डेस्टिनेशन IP एड्रेस। जैसे आप गूगल मैप पे आप जाते हो, राइट? आप गूगल मैप पे कुछ लगा दिया, जैसे यू जस्ट हैव टू गो इन समवेयर इन योर ऑफिस लोकेशन, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आपने जैसे गूगल मैप पे आपने डेस्टिनेशन डाला, इट ऑलवेज ट्रैक डेस्टिनेशन। सोर्स नहीं ट्रैक करता है कि सोर्स पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू डोंट केयर अबाउट दैट। सेम थिंग हैपनिंग विद this particular routing always happens based on the destination IP address, never happen on the source IP address। so आप सोर्स क्या विलेन कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है उससे मैटर करता है। डेस्टिनेशन अगर इस लिंक से स्टोर आया तो ऑल ट्रैफिक विल गो वाया द इधर से ही, चाहे सोर्स जूनियर इंजीनियर के लेकर आ रहा है या सीनियर इंजीनियर के लेकर आ रहा है, इट डजंट मैटर फॉर मी। क्लियर? Based on the source, we can define permit or deny either block. एक मिनट आपकी थोड़ा गजानंद जी आवाज में थोड़ा गूंज रही है, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे एक बार? सर मैं बोल रहा था कि based on the source we can define either I can permit or deny or either can evaluate with the based on source. Can I do that? No, based on source you only do this via the PBR, no other way we have. Or you can do via the access list if you want to block some traffic, but the failover is not going to happen. Failover is not going to happen. You can block the traffic based on the source IP address, destination IP address, based on the source and destination you can set the next hop। but अगर normal routing की बात करोगे तो source कभी routing में check होता ही नहीं है, it is always check the destination IP address, ठीक है? Now coming back to the third questions about the HSRP, right? क्या हम HSRP यूज कर सकते हैं? अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन कि क्या हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं HSRP, बट HSRP भी क्या लिमिटेशन है, क्या वो फेल ओवर कर पाएगा? अब देखो आप लोग,
मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए फायरवॉल नहीं है, ये स्विच है आपका। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अभी आप फायरवॉल की बात ही नहीं कर रहे हो, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्विच की बात कर रहे हैं, एंड वी आर रनिंग द HSRP. So HSRP is the like one of the FHRP protocol, जिसको hot standby redundancy protocol बोलते हैं. अगर नहीं पता है किसी को तो कोई बात नहीं. If you are planning to do CCNP in core ENARSI, you will get that all answers, right? But just मैं आप लोगों ने पूछा, open session है, so I'm just feel free to give the all answers. So HSRP में क्या होता है कि you select one router as the active, one as a primary, और इसको बोलते हैं standby. ठीक है, SB router बोलते हो आप. तो मान के चलो ये लैन का ट्रैफिक है, तो ऑल ट्रैफिक ऑलवेज गो ऑन दिस राउटर, राइट, एंड चेक राउटिंग एंड देन गो टू द इंटरनेट. तो अब बताओ इधर कैसे ट्रैफिक आएगा? अगर एक्टिव है तो गेटवे पे जाएगा, तो यहीं पे चला जाएगा ना. देन हाउ यू विल डू द फेलओवर? जब तक ये राउटर डाउन नहीं होगा तब तक ये ट्रैफिक आपके इधर नहीं आएगा इन नॉर्मल सिनेरियो. GLBP के थ्रू होगा ये तो फिर आपको GLBP यूज करना पड़ेगा गेटवे लोड बैलेंसिंग अगर करना है तो. यू राइट. सो राहुल ने पूछा था, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था. There are two subnet, like on R1 there is another subnet and R2 another. Then one is the active, second one is the passive. So I need to configure the preemption value. I think नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोलते हो. You are saying like again the question कि like दो villains है हमारे पास 10 and 20. So you want to make the 10 should be the primary for this one, 10 should be the active for this one, and 10 is the standby for this one, right? And 20 would be the आपका एक्टिव यहाँ पे रहेगा 20 विलेंस के लिए, और आपका स्टैंड बाई यहाँ पे रहेगा 20 स्टैंड बाई यहाँ. हाँ, ऐसा अगर आप करते हो एंड GLBP नहीं यूज करते हो तो उसमें केस में होगा कि जो 10 का यूजर का ट्रैफिक है, अगर इसके बीच में IBGP नहीं चल रहा आपका, अगेन लिमिटेशन चाहिए, IBGP नहीं चलना चाहिए इसके अंदर. अगर IBGP चलेगा तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे. बट इफ यू आर नॉट यूजिंग द IBGP बिटवीन द लैन एंड आपके दोनों अलग अलग राउटर हैं, तो इस केस में यू कैन डू लोड बैलेंसिंग इन सच वे कि आपका जो 20 का सबनेट का जो यूजर होगा, it is going to hit always this and always going to out this. जब ये डाउन होगा तो अपने आप यहाँ फेलओवर हो जाएगा. 10 का जो यूजर आएगा, it is always going to hit and it will go out. जब ये डाउन होगा तो again it will going to failure this. It is also possible. GLBP यूज कर लो HSRP का, या आप VLAN बेसिस पे आप अगर सेग्रीगेशन करना चाहते हो, that is also possible. Okay. So we मूव आउट द ट्रैक. पोलो अल्टो से हम पहुंच गए थोड़ी राउटिंग पे, बट इट्स गुड, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिला होगा कि क्या क्या अभी टेक्नोलॉजी चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एनी अदर ओपन क्वेश्चन रिगार्डिंग द पोलो अल्टो नाउ? क्योंकि हमने फेल ओवर रिडंडेंसी की और बात कर लिया है, तो एनी अदर क्वेश्चन आप लोग कुछ दिमाग में चल रहा है, यू गाइस वांट टू आस्क? In Palo Alto, there is when I will check the log, it's somehow it's coming aged out. Packet is permitted, but its region is coming aged out. So just I want to know what is the mean of aged out? Why it's coming aged out? So aged out meaning like your application is trying to reach the server with this particular time frame, but उस टाइम में वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो दैट इज बिकम द एज्ड आउट. मतलब सर्वर देखो आपके तो TCP फिन होगा, दैट मींस यू कंप्लीटेड ट्रैफिक. एज्ड आउट मतलब कि आप ट्राई कर रहे हो बट सर्वर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट्स बिकम द एज्ड आउट. सो दिस इज अ नॉर्मल लॉग्स. अगर आपकी कनेक्टिविटी कहीं ब्रेक होती है तो वहां पे आपको एज्ड आउट का कॉन्सेप्ट वहां पे आपको आता है. So we can say that this is not an issue with the network whenever आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपका एज्ड आउट आ रहा है एप्लीकेशंस पे एंड यू सी कि हमारा ट्रैफिक अलाउड आपको फायरवॉल लॉग में दिखा रहा है, इफ इट्स सेइंग द अलाउड एंड देन एड्स आउट, दैट मींस कि यू आर पासिंग द ट्रैफिक एंड आपका डेस्टिनेशन से आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है. राइट, दैट्स थैंक यू. हाँ जी बताइए गौरव, यू आस्किंग समथिंग? सर ये मैं पूछ रहा था, अगर यहाँ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? मतलब पीछे वाले ही लाइक ड्राइंग पे मींस टोपोलॉजी पे, पीछे वाले टोपोलॉजी पे आप बात करें, आ जाएगा तब ना पीछे वाला आ गया. फ्लोटिंग स्टैटिक राउट. अच्छा ये बताओ कि ऑनेस्टली इस क्लास में से मतलब गौरव जी को छोड़कर who all know meaning of the floating static route? ईमानदारी से बताओ, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है कि मतलब इसमें कुछ जज नहीं करने वाला हूं, बस मुझे नहीं पता है. हाँ नहीं पता, दैट्स गुड गुड. बाकी लोग बताओ, जो हैंड रेज करो जिसको पता है, जिसको नहीं पता है. I know. You know, okay.
और किसको पता है? एनीवन आल्सो? हैंड रेज करो जिसको पता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसे। चलो लेट मी डिस्कस, ठीक है। सो आप लोगों ने स्टैटिक राउट तो पढ़ा होगा बहुत, ठीक है, बट व्हाट इज द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट? लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। So, ठीक है, so static route versus floating static route। अगर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भी मेजोरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग कि नहीं पता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा आप लोग आंसर करने को। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहली बात आप लोग समझो कि स्टैटिक राउट क्या होता है। सो स्टैटिक राउट, जो भी राउटिंग आप करते हो, एनी राउट, लाइक जैसे आपने डाला कि कोई डेस्टिनेशन है, जैसे मैं मान करता हूँ 8.8.8, राइट, इसका सबनेट मास्क जैसे आपने 255, एक मिनट, इसको ऐसे ऐसे लिखते हो, आईपी राउट 8.8.8.8 255 255 255 255, और उसका नेक्स्ट होप होता है, जैसे नेक्स्ट होप इसका हुआ वाया R1 का आईपी एड्रेस होगा, नॉट एक्चुअली। सो इसको जो बोलते हैं हम लोग स्टैटिक राउट। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक राउट। इतना क्लियर हो गया? Yes. अब दूसरा है हमारे पास एक ऑप्शन था, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह के राउट लिखते हो, राइट राइट, नेक्स्ट हो सकता है कि ये भी वाया R1 ही हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट इवन। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। इसको टेक्निकली स्टैटिक डिफॉल्ट राउट बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास होता है फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। अब इसका मतलब क्या होता है? अब देखो मैं एक राउट लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको देखना आप लोग, आईपी राउट 8.8.8.8 255 255 255 255 नेक्स्ट होप R1, ठीक है, ये मैंने लिखा, सॉरी, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो एक राउट मैंने ये लिखा और एक और राउट लिखता हूँ, आईपी राउट 8.8.8.8 आप लोग सोच रहे हो कि सर दोबारा क्यों लिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं। 55 255 255 नेक्स्ट R1, और ये नंबर डाल दिया मैंने, मान के चलो 20। ये दोनों राउट हैं। अब पहले का मीनिंग किसने समझा, दूसरे का मीनिंग किसने समझा? अपना हैंड रेज करो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। पहले का मतलब क्या हुआ, दूसरे का मतलब क्या हुआ? देखो सेम है, लास्ट में सिर्फ 21 लिख दे यहाँ पे। अपना अपना हाथ रेज करो ताकि मुझे पता चले, जिसको दोनों का मतलब समझ में आ गया हो। प्रीतम को आ गया, विशाल सर को आ गया, अच्छा गौरव को भी आ गया, और कोई है जिसका मतलब समझ में आ गया? यस, मेरे को भी। चंदन को भी आ गया, ठीक है। सो देखो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का मतलब ये होता है कि अगर आपको सेम डेस्टिनेशन का, चाहे वो डिफॉल्ट राउट हो या कोई स्पेसिफिक राउट हो, सेम डेस्टिनेशन के राउट को अगर आप नॉर्मली एंट्री करते हो तो बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू कितनी होती है स्टैटिक राउट के? 1। बट यू वांट टू इंक्रीज द एडी वैल्यू ग्रेटर देन 1 सेम डेस्टिनेशन राउट को। जैसे ही आप ऐसे एंट्री करते हो, दिस इज बिकम द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। मतलब ये फ्लोट करेगा। ये हो सकता है कि ये आपका R2 हो, R1 ना हो, R2 नेक्स्ट हो जाए, ठीक है, R1 की जगह R2 हो जाए। तो मतलब इसका क्या हुआ कि आपका नॉर्मल केस में ये ट्रैफिक आपका इधर से जाएगा, लेकिन इन केस इट गोज डाउन तो आपका ट्रैफिक R2 से जाने लगेगा। मतलब ये राउट आपका फ्लोट हो गया, एक होप से दूसरे होप से फ्लोट हो गया।
सो दिस इज द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, मतलब कि आप चाहते हो कि मेरे पास 2 कॉपी ऑफ सेम डेस्टिनेशन के राउट रहे हैं, लेकिन जब तक मेरा सब कुछ सही रहे तब तक मेरा प्राइमरी जो इसकी एडी वैल्यू 1 है वो प्रेफर्ड हो। जैसे ही मेरा वो एडी वैल्यू 1 वाला डाउन हो, मेरा दूसरा पिक्चर में आ जाए और वो उसकी तरफ जाने लगे। दिस इज बिकम द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। क्लियर? बहुत इजी है, करके इसके लैब देखना। सर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिली क्वेश्चन है, मतलब कोई सोचा नहीं होगा। जब से मैं पढ़ते आ रहा हूँ राउटिंग स्विचिंग, डिफॉल्ट राउट का कोई एडी वैल्यू होता है क्या सर? डिफॉल्ट राउट इज ऑलवेज बिकम द स्टैटिक राउट, और स्टैटिक राउट का हमेशा एडी वैल्यू 1 ही होता है। तो डिफॉल्ट राउट का भी सर 1 ही होता है? हाँ, वो स्टैटिक राउट ही तो है, स्टैटिक राउट है, स्टैटिक राउट इज ऑलवेज 1। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। स्टैटिक राउट ही, मतलब ये क्वेश्चन हरदम मैं जब बुक नहीं पढ़ता नहीं था तो सोचता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिफॉल्ट राउट इज ऑल्सो, मैं इसे लिखा ना स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, मैंने क्या लिखा ओके देखो यहाँ ओके पे, ओके इसलिए मैंने लिखा कि इसको कंप्लीट नेम इज नॉट डिफॉल्ट राउट, कंप्लीट नेम इज स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, स्टैटिक ओके राउट। ओके ओके। जहां स्टैटिक लग गया, इट्स 1 एडी वैल्यू, ऑलवेज गोइंग टू So बी 1 it एडी वैल्यू। shows in the like command line also the ID हाँ, value. जैसे अगर आप, जैसे मैं एक राउटर ले लेता हूँ सिंपली, अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना मुझे, तो जैसे जैसे दिखाने के लिए आप लोग देखो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि जैसे ये मेरा एक लिनक्स बेस्ड राउटर है। मैं इस टोपोलॉजी के, अब मान के चलो ये राउटर है, ठीक है, इस यहाँ पे अभी 2 राउट इस पे डालूंगा, लेकिन 2 राउट डालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, रुक जाओ, एक और राउटर लेना पड़ेगा मुझे। जस्ट आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि ये फिर कॉन्फ़िगर करेंगे तो होगा नहीं। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। तो इस राउटर पे 2 लिंक लगाता हूँ मैं, ठीक है, एक मान के चलो वराइजन का है, एक AT&T का है। ये चलो मैं इस पे लगाता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर मेकिंग दिस टोपोलॉजी क्विकर। ये राउटर है आपका, अब मान के चलो कि 2 लिंक इस पे लग गया। मैं टोपोलॉजी क्लियर करता हूँ। अब ये आपका लैन का, या यहाँ मान के चलो ऐसे टोपोलॉजी है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी राउटर है, इसके पीछे आपका लैन है। अब आपको इस पे फ्लोटिंग स्टैटिक राउट डालना है। आप चाहते हो कि डिफॉल्ट राउट, देखो अभी एडी वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा 1, और दूसरे का आप बढ़ा सकते हो। नो किया हमने। जस्ट मैं यहाँ गया, तो पहला डिफॉल्ट राउट डालता हूँ, आईपी राउट 0.0.0.0 और नेक्स्ट स्टॉप में डालता हूँ जैसे 111, अभी कन्फिगर नहीं, डाउन दिखाएगा। और दूसरा मैं डालता हूँ, देखो 2.2.2, बट इसके आगे मैं डालता हूँ 21। अब देखो यहाँ पे ये दोनों का शो रन आईपी राउट करोगे तो, सॉरी, इंक्लूड, ये राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो 2 राउट आ गए ना आपके, तो जो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा, जैसे आप टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करोगे, इंटरफेस आप आ जाएंगे, तो ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा विद एडी वैल्यू 1 के साथ। जब ये डाउन होगा लिंक, तो ये आपको ट्रैक भी करना पड़ेगा, IPSLA के थ्रू ट्रैक करना पड़ेगा, या फिर प्रोटोकॉल लिंक के प्रोटोकॉल के थ्रू इसको ट्रैक करना पड़ेगा। देन दिस विल इज गोइंग टू बिकम द सेकेंडरी। सो ये फ्लोट हो जाएगा, ये राउट यहाँ से फ्लोट हो जाएगा। ओके, ठीक है गौरव जी? ठीक ठीक, ओके ओके। So it's very good discussion guys. Any other question we have? I think आप लोगों को ज्यादा अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, still we have a time. Else we'll start with the firewall configuration, right? We'll start from very zero next class Friday को, and we'll do the entire firewall configuration from very scratch. जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि firewall दिखती कैसी है, आपको उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फायरवॉल के अंदर कैसे आपको इनिशियली कंसोल लेना है, कैसे उसको GUI से एक्सेस करना है, कैसे उसको टेलनेट एक्सेस करना है, क्या क्या उसके पोर्ट्स होते हैं, उस हर एक पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, राइट? आपको अगर सामने से फायरवॉल कोई दे दे तो कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फायरवॉल। सो दीज और वी आर गोइंग टू लाइक डू द डीप डाइव्स ऑन दिस फ्राइडे, सो डोंट मिस द सेशन, राइट? एंड we'll start from very scratch. So अभी तक जो भी हमने सेशन किया, that's all to just understand the basic fundamentals and more about the Q&A session. But now we are going to do actual study from this Friday of this Palo Alto session. Okay, so day 0 is going to be start on this Friday, and we'll start from the initial configuration of the Palo Alto Firewall. So I would request everyone to just have to join the session and enjoy that. Sir, in FortiGate will support policy based or route based? FortiGate
देखो जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं FortiGate 14.8 बोथ आर द सेम, बट एक आपका प्रोडक्ट होता है, एक कंपनी का नाम है, तो ऑलवेज पीपल कंफ्यूज, राइट? तो बोथ आर सेम, बट आपका FortiGate इज प्रोडक्ट, 14.8 इज अ कंपनी, ठीक है? सो आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, दे बोथ सपोर्ट द आपका पॉलिसी बेस्ड राउटिंग एंड द आपका सॉरी पॉलिसी बेस्ड वीपीएन एंड राउट बेस्ड वीपीएन। डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में डिप्लॉय करते हो। तो अगर आपको दोनों साइड पॉलिसी बेस्ड वीपीएन है तो पॉलिसी बेस्ड कन्फिगर कर लो, अगर आपका दोनों साइड डिफरेंस भी है तो भी सपोर्ट करता है, बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सारे सपोर्ट करती हैं। सर एक साइड अगर पॉलिसी बेस्ड है और एक साइड राउट बेस्ड, तो सपोर्ट नहीं करेगा ना? करेगा करेगा, चलेगा चलेगा, तभी तो बोल रहा हूँ कि इट इज गोइंग टू वर्क वेल। ओके, देन पालो अल्टो सपोर्ट ओनली राउट बेस्ड है? नहीं, दोनों वो भी करता है, बोलता हूँ सारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल दोनों करते हैं सपोर्ट, दोनों करता है। लेगेसी जो फायरवॉल थी, जो भी लेगेसी फायरवॉल थी, दे ओनली डू द सपोर्ट फॉर द पॉलिसी बेस्ड, राउट बेस्ड नहीं करती थे लेगेसी जो फायरवॉल्स थी, बट अभी सारे फायरवॉल सब करती हैं। So we can see in the practical ना policy based and route based in Palo Alto. हाँ हाँ, आपको बाय डिफॉल्ट जो राउट बेस है तो बिल्कुल आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, राइट? पॉलिसी बेस टेल की कैसे पॉलिसी बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तभी तो मैंने फंडामेंटल बताया ना, यू विल गेट द लाइक हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर, क्या डिफरेंस होता है। बहुत 2 लाइन का डिफरेंस होता है, बस एक ACL में जाकर परमिट करना होता है। जैसे ही आप समझोगे ना, तो एक ACL बनी होती है, उसमें जाके सोर्स एंड डेस्टिनेशन डाल देना होता है, दैट्स बिकम द पॉलिसी बेस। तो बता दूंगा आपको, ठीक है? So Habibul is asking sir exam cost and Habibul actually exam is just going to be cover, आप ये दोनों क्रैक कर सकते हो एग्जाम आफ्टर दिस सिलेबस, PCNA भी कर सकते हो और PCNSC भी कर सकते हो, राइट? बट आई वुड रिकमेंड कि आप PCNA मत करना, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, डायरेक्ट PCNSC करना, एंड द कॉस्ट इज गोइंग टू बी अराउंड $175। अभी तक का जो लेटेस्ट है इसका आपका 155 है, बट दिस एग्जाम इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर आपको करना है तो यू कैन डू दैट, अगर कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो, बट यू जस्ट गो फॉर द PCNSC आफ्टर दिस सिलेबस। आई एम श्योर यू गाइस कैन क्रैक दैट वेरी इजीली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, so I believe we are good for today. Shall we connect on the Friday then? Okay. Sure. All right. Thank you so much, guys. Have a great evening. everyone. Good night, everyone. See you on Friday. Bye bye. Take care. Hello, everyone. Very good evening to all. Hi, everyone. Let me see. All right. Let me mute. Someone voice is going. Okay. Good evening, everyone. Good evening, Vishal sir. So I hope my screen is visible to everyone, right? It is. Thank you. All right. So let's start our session without any further delay. And today's session is very interesting, right? So we'll learn how basically firewall is going to be configured, right? So before I can explain how the firewall is going to configure, we'll just try to understand about the little bit about the physical appearance of the Palo Alto firewalls, right? We'll try to visualize if you're working on any devices, how basically device looks like, right? So at least you having the good understanding. So session will be again in both Hindi and English. So we'll try to talk in both language. So anyone having any challenges to understand these two languages or either of them, so just let me know. So I'll try to explain either Hindi or English, whatever you feel comfortable. Okay. All right. So I can see most of the people already joined. Okay. So let's start. Right. First, I would like to explain a little bit about labs. So let me explain from very scratch. So you will basically get the lab access to just complete the all configuration, all testing, whatever I'm going to configure here via EVNG lab or by PNet lab. Both interface is similar. Okay. So आप लोग यहाँ से किसी से भी you can do the configuration. There is no problem. You'll get the similar kind of the interface.
So you just have to access this particular URL, or you'll get the new URL instead of this one. The port number will be the only difference. Rest, everything will be the same. And just you have to put your username and password, and you have to select the HTML console. In either case, even you are doing on the PNet lab or the EVNG, you always have to select the HTML console, HTML5. In PNets, maybe you'll find this kind of the console. Let me just show you. So here there is a default and there is a HTML console. So always you have to select this one. Okay, this is the first thing you have to understand, right? You never have to select default console or in this section HTML5 desktop or native console. You don't have to, इसको नहीं select करना इन दोनों. You just have to select the HTML5 console. In EVNG or PNet, basically you'll just have to HTML console and your username, your password, and this captcha one in the PNet lab. Okay, so let me just start. So I'll put the admin username and password because I have the full access, and then I have already selected the HTML console. Then I'll sign in. Once you do the sign in, you'll find the lab interface, right? So probably you'll get a page like this. You'll get the page. You'll find the multiple labs like Day 0 labs. You'll find the Global Protect, GRE tunnels, Layer 2 interface, Layer 2 with the multi-valence, NAT. You'll find the active, passive, active, tap mode labs, panorama labs, site-to-site VPN labs. Okay, you'll find that some kind of content user ID labs, vWire labs. So almost whatever the technology we have to cover in the Palo also, you'll find everything to be available and going to be tested in this particular lab. Okay, so all content, I'm not going to explain in very deep. So what all content you are going to get, like the flow logic, single pass architecture, initial configuration, which we are going to do right now in today's session. Okay, and also we'll do the interface configuration, security zone, layer 2, layer 3, virtual wire, tap mode, sub interface, DSCP, and virtual router. In NAT section, you'll find that multiple type of NAT, right? Source NAT, destination NAT, U-turn NAT, dual NAT. इसके साथ साथ policy भी आपको समझ में आएगा, policy administrations, right? कैसे policy बनती है and how it look like, policy का मतलब क्या होता है. These all thing is going to be covered in the very deep dive. Along with that, we'll do the very good testing about the all applications, how the application, even on the licensed firewall, every feature is going to be explored. Antivirus feature, it's all lives. It's not like theoretical and none of the application or none of the feature we are going to test. Every feature, this is my commitment. Every feature I'll test on the firewall, and you guys are also able to test. URL filtering, vulnerability filtering, vulnerability protection, data filtering, DOS protections, wildfire, file blocking. So these all I will show in the live, and these labs is capable to do all testing. Even the cell decryption, outbound, inbound decryption, you'll do the advanced labs for that. And after that, you'll understand about the user ID. For that also we have lab AD server, live AD server available in my labs. So you'll guys understand how the AD can be integrated, how the FTP server can be integrated, how the Kali Linux machine can be integrated. Okay, these all are designed in such way so you can do all testing without any issue. Okay, so this all things we'll discuss one by one. Then after we'll discuss about that site-to-site VPN, Global Protect, all deep dive. You'll test how the site-to-site VPN is going to be configured, how the Global Protect is going to be configured, dashboard, basic logging, reporting, panorama understanding, and little bit configuration, whatever you can do, because the panorama license, we don't have full license. So we'll try to cover 80-90% things, but 10% still you have to test on your original devices. And then finally, we end with the session with the active passive, like the active HA, that is a high availability, active passive and active. Two modules we are going to cover. So this will be a short course content. I'm just revising you all. We're going to cover in this module, right? So first thing you have to understand, right? If you are the security engineer or might be the firewall engineer, and you having a very good knowledge about the Palo Alto Firewall. So probably we all training doing in the virtual world. There is no hardware, there is no physical device. So probably I'm expecting you guys know about the routers, you guys know about the switches. सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया ही होगा, and आप लोग ये भी आइडिया होगा switch कैसा दिखता है and router कैसा दिखता है, right? So similarly, when you are going to become the Palo Alto engineer,
Palo Alto Firewall engineer, you should know and you should visualize, because once you visualize the things, it is going to be long lasting memory in your mind. If you learned only like a study, or you're just learning the scripts, that is easily forgettable, and you can be, you know, not going to remember for a long period of time. So similarly, let's try to explain. Let me try to explain Palo Alto Firewall image, and I'll try to fit this image in your mind. So Palo Alto Firewall, just go in the Google and try to search it, and just go in the image, and you'll find a lot of image available on the Palo Alto images available on this particular Google. So let me just open any of the firewall. You can see these all are the firewalls. Some are the small firewalls, some are the big firewalls. This is the again firewalls. So if I'm opening any of the firewalls, right? Let's suppose this is the one of the firewall. That model is PA220 models, right? So let me quickly brief you. This is the hardware based firewalls. So हमारे पास virtual firewalls होती हैं, हमारे पास hardware based firewall होता है, दोनों तरह की firewall होती हैं. So this all labs, whatever I'm doing in the labs, these all are the virtual firewalls, right? This is not hardware cannot be, you know, integrated, because the hardware, I have the firewall in office, like people are exploring jisko chahiye hardware pe, they can do that, but that is a limited access, because we cannot buy for the everyone. Like if there is a 20 students in a batch, so we cannot buy 40 firewalls. It's a very costly. It's not like 1,000 or 2,000. It's like come in the multiple lakhs rupees to one firewalls. So it's like a huge. So all is same feature is going to be tested and going to be explored. Hi sir, good evening. Hello, good evening. Hello. मैं कितना लेट हूँ मुझे बता दीजिए, क्या क्या मिस कर दिया? कुछ नहीं, just we are starting. Okay, no late. Okay, thank you. All right, so these all are going to be covered in the virtually, so you'll get each and everything virtually, right? So but still, because you are going to work in the production, so आपको फिजिकल फायरवॉल के बारे में भी पता होना चाहिए. सो अगर मैं फिजिकल फायरवॉल के बारे में बात करता हूं, सो यू फाइंड वी हैविंग अ लॉट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल इन द फायरवॉल्स. वर्चुअल तो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. देयर इज स्टिल मॉडल फॉर द वर्चुअल VM सीरीज हैविंग 100, 200, 300, 400, 700, 800, and we can customize the hardware as well. But when you talk about the physical firewalls, so physical firewall हमारे पास जो बहुत ही बेसिक फायरवॉल है, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी एंड ऑफ लाइफ ऑलरेडी इट्स हैपन. PA220 फायरवॉल, ये इनिशियल फायरवॉल है, ये फिजिकल फायरवॉल है, राइट? सो आप PA220 फायरवॉल को बाय कर सकते हो. क्यों बाय करना है, आई विल एक्सप्लेन, गिव मी सम टाइम. सिमिलरली आपके पास और भी फायरवॉल्स होती हैं, जैसे PA420 भी होता है, राइट? 440 भी होता है. इसके बाद आप 820 पे आ सकते हो, 850 पे आ सकते हो, राइट? So these are the high end firewall if I compare to the 420 or 220. So इससे ज्यादा higher firewalls हैं. Now you can move to the 3220 firewall model, 3250, 3260. These are the again next generation, means all are the next generation firewall, but they having the high capability, high capacity, high throughput, high features, right? So ये भी हमारे पास firewall है. Then you'll move to the next, that is a 5280 firewall. This is again a physical firewall. So and the last, that is the highest, like we can say throughput firewall or high capacity firewall, that is a 7050 firewall. So if someone is going to ask you after this training, right, one thing is going to be remain common. चाहे आप 220 firewall configure करो या 820 करो configuration, आप 320 करो configuration, या कोई और high end, या फिर virtual firewall configuration करो, one thing is going to be very common. GUI सबका सेम रहेगा, GUI सबका सेम रहेगा. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि have you work on the real firewalls, you should say interview में yes I have worked on the real firewall, but you should know the which model. Might be they ask which model. तो आपसे पूछ देता है कि 820 पे आपने काम, आपने बोला कि 820 पे मैंने काम किया. So you should able to explain what is it like feature of the 820 firewalls. This you should know, right? So अगर आपको ये पता है and you just saying like कि I'm the hands-on experience, I am working on the Palo Alto firewall, that's good enough to, you know, justify your knowledge. Because जो आप 820 में configuration करोगे, ऐसा नहीं है कि virtual firewall में कुछ अलग हो जाएगा. They all are going to be replica 100% same. Only difference is going to happen might be if you're doing the 820 firewall configuration or 220 firewall configuration. So इसके बीच में देखो आपको बहुत सारा डिफरेंस आएगा. जैसे थ्रूपुट इसका कम होगा, राइट?
इसमें सेशंस कम होंगे, इसमें वर्चुअल राउटर्स कम होंगे, इसमें सिक्योरिटी जोन आप कम बना सकते हैं, इसमें पॉलिसी कम बना सकते हो। बट अगर जैसे ही हाई एंड पे जाओगे तो ये सारी चीजें देखो, नंबर ऑफ स्पीड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ वर्चुअल राउटर्स बढ़ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ सिक्योरिटी जोन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ जाएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, you having a more features, more thing you are going to do in the firewalls. But rest, basic fundamental, basic dashboard, basic feature, it remains same. You understand? Like you having a one bus, just think about one having a bus, one having the car. Both can go from one place to another place, right? But the only difference, car can carry only the 4 people or 5 people inside, but bus can carry might be the 100 or 60 or 70. So this is the difference, right? Prices might be different, but both can go in the similar speed. Both can go on the one place to another place. Both are going to provide you the same kind of service, but only the features are and the like other capability is going to be changed. Same thing is going to happen here, right? So अगर आप virtually firewall पे काम कर रहे हो या physically कर रहे हो, it doesn't matter for you. You just have to think कि firewall के core concepts क्या है, policy का मतलब क्या है, you just have to understand NAT का मतलब क्या है, you just have to understand decryption का मतलब क्या है, content ID का मतलब क्या है, you just have to understand different deployment methods of the Palo Alto Firewall, architecture of the Palo Alto Firewall, zone, policy, HA, routing, these all things are like key things. अगर आपको इतना पता है and you even you are lacking in the hardware, so अगर true interviewer होगा ना, that is he is going to select you. But why should you left this small thing? अगर आप इतना preparation कर रहे हो तो just you remember ना, just I'll give this all detail to you. आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और आप just गूगल पे जाकर सर्च करो कि PA220 के फीचर्स, तो आपको निकल के आ जाएगा। और बाकी तो ये स्लाइड में है ही है, you just have to know about this. So this is a different model of the firewall. That is a physical firewall, you should know, right? Now next thing is that कि अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि हाउ फिजिकल फायरवॉल हैविंग व्हाट आर डिफरेंट मॉडल इन हैविंग इन द फिजिकल फायरवॉल। अब हमारे पास बात आती है कि हाउ फिजिकल फायरवॉल लुक्स लाइक्स। अगर आपको एक फिजिकल फायरवॉल को इमेजिन करना है लाइक अपने दिमाग में, तो कैसे आप उसको विजुअलाइज करोगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मेरी फिजिकल फायरवॉल कैसी दिखती है और उस पे क्या होता है, कैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो जस्ट गिविंग इन वन ऑफ द बेबी फायरवॉल दैट इज अ PA220, उसका डैशबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, सो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर PA220 firewall we having, this is a front dashboard, you can see this is the front dashboard. Similarly any firewall if you find, आपको कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, मींस फिजिकल डैशबोर्ड, I mean to say actual logical dashboard I'm going to say show after some time, but you will find the physical like appearance how it is going to be looks like. So यहाँ पे देखोगे so you can find here multiple ports we have, like port number 1, port number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total 8 ports we have, right? This can be more if you are going to higher version of the firewall, but this is the small version of firewall, this having the only 8 ports. But if you are going to higher like 320 series of the firewall, 5000 series of firewall, 7000 of the series of firewall, so you'll having the modular firewall like chassis based firewall, so they're having a more blades, more ports, so you're having the more connectivity, right? So but logic is going to be remain same. So let's suppose if you're having the bigger firewall, you'll find the more ports in, if I compare to this, let me just mute someone. Okay, so why I'm not able to mute him. So you'll find the more. So if I'm talking these ports, this port you can see here, right? These all ports which I'm drawing in the box, why basically these ports are using. So these are the normal ports and they having only two purpose. What are the two purpose? So first can be connected with your LAN network or can be connected with your WAN network. This is only two purpose we have for these two particular, this particular ports type. So might be, let's assume this is your WAN network, right? ISP is
wanted to make one connection, or sorry, let me just use my pen, or just use here. So let's suppose this is ISP. ISP wanted to make a connection with your firewalls. For what? Might be this is for the internet ISP. So ISP physical cable, this could be the copper, right? Or might be the fiber. Some firewalls module also support the fiber, fiber also, sorry. So this could be the copper or fiber. This depend, like if you're having a higher models, you will find the fiber port as well. But majority of the case will find the copper. So the cable is going to be terminated from the ISP device. This could be the router and to your firewall. So this firewall port is going to act as a WAN port because you're having the ISP connected, right? So now your firewall having connectivity to the out of the world from your office, means you are connected to across all globe to access the internet logically, right? So यहाँ पे अगर कोई यूजर बैठा है और फायरवॉल अगर इंटरनेट से बात करना चाहे, they can easily talk, there is no problem at all, ठीक है? But what about the user who is behind this firewall? Might be one user is connected with this switch. This is your LAN switch. So this user wanted to access, might be this is one of the PC which is connected here, one of the another PC connected here. So these two user is connected here and they wanted to access the internet. So again, this LAN should be connected to either of the ports of this particular firewalls. So now once you connect this port for the LAN switch, for the getting the IP address, might be from DSCP, which is going to be configured on the firewall, or might be not that DSCP could connected on the switch, but still the gateway is to your firewall. So PC is going to land to your gateway, and then after you have to do some routings here, then your LAN and WAN is going to be connect together. Probably you have to get the policy, you have to get the NAT, then your user can go to the internet. So this is the two purpose we can use to just connect the LAN. LAN could be anything, not switch. It might be your DMG, again, parts of your LAN, your trust zone. I'll explain what is a zone. You might be have the in zone, but whenever I talk about the anything about the LAN, either DMG, trust, in, or might be the my LAN, they all are going to stay in a LAN category. But when something you are talking about the WAN, जब हम WAN की बात करते हैं, so आपको इंटरनेट की दुनिया से बाहर जाना है, then it is going to consider as a WAN. So this firewall, this port having this only responsibility. Okay, either it is going to connect to the ISP or it is your LAN network. This is clear to everyone why these ports are being used here. Anyone having any doubt till here, or everything is clear to everyone? Please let me know if anyone disagree or having different mindset of understanding. So I'll try to clarify it. Pankaj sir, one question. Yes, please, बताइए. सर इसमें MDIX इनेबल होता है पोर्ट पे, जैसे फायर पालो अल्टो 220 में या इसके हायर वर्जन में, अगर पालो अल्टो टू पालो अल्टो हम कनेक्ट कर रहे हैं या नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे MDIX इनेबल होता है कि नहीं इस तरह के पालो अल्टो डिवाइस में? So देखो MDIX जो हमारा होता है, that is like ये इसमें हमारे पास जो सिंपल सा दो तरह कनेक्शन होते हैं, या तो आप कॉपर यूज करो तो फाइबर यूज करो, राइट? आप जो पूछ रहे हो MDIX, ये इसमें नहीं सपोर्ट करता नॉर्मल केस में, बट आपको अगर कंसोल यूज करना है, कंसोल, राइट? सो आई थिंक उसका पर्पस आई थिंक MDIX से जिसमें क्रॉसओवर केबल यूज करते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है, बट नॉर्मल फायरवॉल टू फायरवॉल कनेक्शन दैट इज गोइंग टू रिक्वायर द RJ45 or could be fiber, or any LAN WAN connection is going to be used as a your क्या बोलते हैं, फाइबर और कॉपर, यही हो सकता है. So that means सर अगर फायरवॉल टू फायरवॉल हम RJ45 से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको क्रॉस केबल ही चाहिए यहाँ पे? नहीं, RJ45 and RJ Cat5 and Cat6 जो हमारा केबल होता है, that is going to be used here. क्रॉस हो या स्ट्रेट कोई भी चल जाएगा?
नहीं, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है। क्रॉस और स्टैट का जो हमारा RJ45 होता है बाय डिफॉल्ट हमारा, सर जैसे नेटवर्क टू नेटवर्क डिवाइस क्रॉस यूज होता है, नेटवर्क टू होस्ट स्ट्रेट यूज होता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस ही होगा ना फिर RJ45 हाँ हाँ, तो केबल मतलब ये केबल टाइप। मुझे जब भी ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं पालो अल्टो टू पालो अल्टो, तो वहां पे क्रॉस केबल ही यूज करना पड़ेगा शायद। और सर एक क्वेश्चन और था मेरा, अगर आपका राउट मींस आईएसपी का टर्मिनेशन जैसे पालो अल्टो पे हो रहा है, अब पालो अल्टो से पालो अल्टो का टर्मिनेशन एक हो रहा है, मान लीजिए एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक 20वीं मंजिल पे है, तो वहां पे PA220 क्या हम यूज कर सकते हैं विद द SFP? PA220 हम यूज कर सकते हैं SFP के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशंस, केबल लेंथ की कोई लिमिटेशंस नहीं है अभी तक। तो फाइबर इज गोइंग टू बी वेरी कैपेबल टू विद लो लेटेंसी, हम कर सकते हैं उसमें यूज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है विद इन द बिल्डिंग अगर आपको करना है तो। क्योंकि फाइबर इज लो लेटेंसी केबल, कॉपर का रहता है कि 100 मीटर से ऊपर करोगे दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट फाइबर इज स्टिल गोइंग टू बी वर्क फॉर यू। बट ऐसा ऐसा जनरली हम करते नहीं है। व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस वे? मतलब ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो हो गया, रियल सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है कि आपको 2 PA 20 फ्लोर या 30 फ्लोर पे लगाने हैं एंड यू जस्ट हैव टू मेक द एज रिपेयर। तो सर मींस क्रॉस ही यूज करेंगे, पालो अल्टो टू पालो अल्टो मींस हाँ मेरा। हाँ, कैट 5 कैट 6 हमारा क्रॉसओवर ही आता है, राइट, एंड वी जस्ट हैव टू यूज, राइट। ओके ओके। हाँ, तो उसमें आपको कंसोल वाला में स्ट्रेट केबल चाहिए, राइट, बट आपको ये क्रॉसओवर केबल चाहिए, ठीक है। कंसोल में रोल ओवर सर आई थिंक हाँ यूज हाँ, होता है। रोल ओवर वही जो हमारा केबल होता है, दैट इज गोइंग टू बी, जिसमें हम सीरियल केबल कनेक्शन करते हैं एंड देन वी जस्ट हैव टू मेक दैट पोर्ट सीरियल जिसमें कन्वर्टर होता है, ठीक है। सो ओके सर ओके। आप लोग को ज्यादा याद होगा क्योंकि आई जस्ट टच दिस ऑल सर 15 मैंने ईयर बैक। फिजिकल लेयर पे काम किया है पूरा मैंने हाँ केबल्स हाँ बनाई है। हाँ, आई नो दैट, दैट्स आई एम सेइंग ना कि लॉजिकल फील्ड वालों को ज्यादा पता होता है कि केबल कौन कौन से लगते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, सर एनी अदर क्वेश्चन? यस बताइए सर। एक हाँ सर, ये अगर हम आईएसपी में बैठे हैं और आईएसपी का हाँ। नेटवर्क हम देख रहे हैं, तो वहाँ गेटवे के नीचे लगेगा ना ये फायरवॉल तो, और कौन से मॉडल का वहाँ पर सुटेबल रहेगा, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम अगर बोलेंगे नहीं तो नहीं, उसमें? एक्चुअली मॉडल ऑफ द फार्मर इज टोटली डिपेंड कि रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा मॉडल ऐसे नहीं डिसाइड होता है कि वी कैन से कि दिस मॉडल लगेगा या कोई दूसरा मॉडल लगेगा। देखो नहीं, अब अगर सर नीचे से अगर ब्रॉडबैंड के मतलब 5 लाख कस्टमर आ रहा है, 5 लाख हाँ कस्टमर आ रहा है, गेटवे से निकलना है बाहर, उनको एयरटेल पर या टाटा पे जाना है एक हाँ, आईएसपी के, तो वहां पर गेटवे के नीचे ही फाइबर लगेगी, तो कौन सा मॉडल लगेगा जो कि इतने कस्टमर को so सपोर्ट करेगा, so जैसे 5 5 लाख lakh कस्टमर? customer, 5 lakh customer is a huge, 5 lakh user is a huge, it's not a practical scenario। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब आई कैन से कि मतलब आपके जितने भी MNCs हैं उनका भी कई सारे MNC के मैन पावर इतना नहीं होता, राइट। तो पहली बात नहीं तो नहीं, ये है। मैन पावर नहीं, नहीं मैन पावर नहीं सर, हाँ हाँ। मैन पावर नहीं, ये आईएसपी के नेटवर्क की बात करें, आईएसपी के अंदर हम बैठे हैं और हमारा हम्म ब्रॉडबैंड का कस्टमर है, 5 लाख कस्टमर ब्रॉडबैंड का है, और हम्म उसको इंटरनेट पे लेकर जाना है हमने, तो उसके लिए तो फाइबर लगती होगी ना, आईएसपी नहीं के नहीं, अंदर की बात करो। ब्रॉडबैंड जो कनेक्शंस होते हैं दे नेवर यूज द फायरवॉल डेडिकेटेड फॉर द ब्रॉडबैंड कस्टमर्स, दैट इज प्रोवाइडेड ओपन इंटरनेट हमारा होता है उसमें। आपकी जो फायरवॉल ब्रॉडबैंड लगता है उसी में कुछ फीचर्स होते हैं बेसिक, बट दे नेवर, ISP नेवर यूज द फायरवॉल टू जस्ट मैनेज द फिल्टर द डेटा ऑफ द एंड कस्टमर। अगर वैसा करेंगे तो दे विल डाई। समझ रहे हो बात को? अगर नहीं एयरटेल करने सर, लगे, बताओ, एयरटेल अगर अगर करने बाहर लगे, उसके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, बिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, थिंक अबाउट इट। और ये नहीं लाइक वराइजन और माइट बी स्प्रिंट और एनी अदर लाइक जो भी प्रोवाइडर हमारे पास हैं, सो दे नॉट फिल्टर द एंड यूजर्स। आपका जो डेटा होता है जो आप घर में ब्रॉडबैंड यूज करते हो, दैट इज नॉट फिल्टर्ड। द फायरवॉल इज मोर अबाउट द इंटरप्राइज। दो तरह का इंडस्ट्री है, एक ISP है, दैट्स ओपन इंटरनेट, राइट, कोई भी कनेक्ट होकर कहीं से भी एक्सेस कर रहा है। वन इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज समथिंग कि आपके कंपनी का सिक्योर कनेक्शन है, सिक्योर डेटाबेस है, उसको अपने एम्प्लॉय को, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने नेटवर्क को आपको सिक्योर करना है, देन इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू, राइट। सो इंटरप्राइज इज मोर अबाउट कि आपके डिपेंड करता है कितने एम्प्लॉयज हैं, हाउ मेनी एम्प्लॉय यू हैव, हाउ मेनी application you are accessing from your office to the any internet based destination or SaaS based destination or cloud based destinations, so और किस टाइप की एप्लीकेशन है, then it is going to be decided which firewall is going to use। अगर मेरे पास कंपनी में 10-20 यूजर हैं तो मैं सिंपल 220 फायरवॉल यूज करूंगा,
राइट, बट मेरी कंपनी में 10,000 यूजर हैं, सो आई ऑलवेज गोइंग टू थिंक अबाउट दिस फायरवॉल्स, राइट, समझो बात को, क्योंकि जितने नंबर ऑफ यूजर होंगे यू रिक्वायर द हाई नंबर ऑफ द सेशंस, राइट, वो अलग अलग। सो देखो इसमें 40,000 मैक्सिमम पॉलिसी बना सकते हैं आप, इसमें देखो सेशंस देखो आई थिंक अराउंड 24 lakhs है या मोर देन दैट है, ठीक है, तो जिसको काउंट कर लेना आप लोग। सो इट इज गोइंग टू बी मोर सेशन, क्योंकि आपको उतने 10,000 20,000 यूजर होंगे, दे आर गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर सेशन। अगर मैं बात करूं यही आईएसपी के पास अगर यूज करना हो तो इट विल बी डेड, दिस फायरवॉल नेवर गोइंग टू सर्वाइव, बिकॉज आपके वन सिटी के अंदर मोर देन 1 million 2 million यूजर्स हैं, राइट। सो ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? देयर इज नो फायरवॉल इज क्रिएटेड फॉर द आईएसपी हु गोइंग टू मैनेज द एंड यूजर लाइक यू नो कनेक्शंस। सर जैसे गेटवे से हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं ऊपर से, और हमारे डेटा सेंटर में कोई सर्वर रखा है या कुछ भी है, तो वो एक्सेस तो उसी सर्वर को कर रहे हैं, तो उसके लिए फायरवॉल तो लगाना ही पड़ेगी कोई ना कोई। तो आप ब्रॉडबैंड की बात करो या ऑफिस की बात करो, दो अलग नहीं, अलग ब्रॉडबैंड ओनली ब्रॉडबैंड, एक मिनट, ब्रॉडबैंड का डेटा सेंटर देखो, ब्रॉडबैंड का आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, राइट, आपके पास एक राउटर लग गया, राइट, लग गया ना, आप यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट हो गए अपने आईएसपी से, राइट, या आपका आईएसपी यहाँ कनेक्ट हो गया। अब इस आईएसपी से इस यूजर को गूगल एक्सेस करना है, तो आईएसपी काम होता है इस गूगल से इसकी रिचेबिलिटी बना देना, याहू यूज कैसे एक्सेस करना, तो आईएसपी से। अब ये किसके किसके फायरवॉल लगाएगा, कहाँ कहाँ फायरवॉल लगाएगा? आप यूजर एक बैठा हुआ है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, एक बैठा हुआ है मुंबई में, एक बैठा हुआ है बैंगलोर में, एक बैठा हुआ है किसी हरियाणा के स्टेट में, कहीं भी बैठा हो सकता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर स्टेट में वो फायरवॉल लगाया, हर रीजन में फायरवॉल लगाया टू जस्ट गो टू इंटरनेट, क्योंकि यूजर को कितने ट्रैफिक एक्सेस कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, किस वेबसाइट को, इंडिया को कर रहा है कि यूएस को कर रहा है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द वेबसाइट एंड एप्लीकेशन वी हैव। सो फायरवॉल कैसे फिल्टर कर पाएगा? सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। आईएसपी नेवर एवर जस्ट डूइंग द फिल्टर ऑफ द एनी यूजर ट्रैफिक। हाँ, कुछ गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होते हैं जिसमें जैसे चाइना का आप ले लो, चाइना की बात कर लो, ग्रेट चाइना फायरवॉल है, ठीक है, वो क्या करता है कि पूरे आईएसपी के लिए गेटवे है कि फुल आईएसपी जितने भी यूजर आ रहे हैं अगर उनको किसी दूसरे कंट्री से बात करना, दे हैव टू क्रॉस द चाइना ग्रेट चाइना फायरवॉल्स। सो उसमें क्या है, स्टिल दिस चाइना एज पर माय नॉलेज वहां पे फेसबुक नहीं चलता, वहां पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, ऑल आर बैन देयर, राइट। क्यों बैन है? क्योंकि वो अगर कोई यूजर अगर फेसबुक और इस व्हाट्सएप से कनेक्ट करना चाहता है तो आपकी जो ग्रेट चाइना फायरवॉल है वो उसको ब्लॉक कर देती है। इसी तरीके से इंडिया में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कुछ हमारी प्रोनोग्राफी बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, एडल्ट और गैम्बलिंग बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन फ्रॉम एनी ब्राउजर, यू कैन ट्राई इट। आप जब खोलोगे तो वो आपके बंद हो जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट का नॉर्म्स हैं। तो होता है क्या है कि इन रिगार्ड ऑफ द आपकी एयरटेल आईएसपी है, इन रिगार्ड ऑफ आपका वोडाफोन आईएसपी है, कोई और आईएसपी है XYZ, इट डजंट मैटर फॉर द ISP point of view, it matter for the government point of view. So government having their own set of the rules and firewalls जहाँ पे वो content and website को match करता है and that is going to filter it out. So वो norms को follow करना पड़ता है। उस केस में they are going to filter some website, some application, but not all. It is not practically possible क्योंकि millions and billions of the application है। कौन यूजर क्या कर रहा है? मैं एक यूजर हूँ, मैं पूरे दिन में I think everyone is using, अगर एवरेज डेटा आप देखो इंटरनेट का, so everyone is using the data like to accessing the internet per day 2 to 3 hours. This is average of the human beings. लेटेस्ट सर्वे पे जो हुआ है 2 से 3 घंटे लोग यूज करते हैं। अब 2 से 3 घंटे में क्या क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं, दैट इज नॉट ट्रैकेबल, नॉट पॉसिबल टू डू द ऑल ट्रैक बाय द आईएसपी। यस प्लीज गो अहेड। सर अगर आईएसपी में मेरे पास कोई राउटर लगे, स्विचेस लगे, अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी लगाऊंगा तो ब्रॉडबैंड कस्टमर से कोई भी हैक करके मेरे राउटर स्विच तक पहुंच सकता है, जो कि डाटा सेंटर के अंदर बहुत सारे राउटर स्विच लगे, या कोई ऐसा सर्वर रखा हुआ है मैंने जो कि बाहर से एक्सेस होता है, तो अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो कैसे वो करेंगे? नहीं, सिक्योरिटी तो देखो, आपके जो राउटर है यहाँ पे आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन दिया, राइट, इस राउटर से तो आपके ब्रॉडबैंड के बहुत सारे डीएसएल कनेक्शन में ना डीएसएल लेवल की सिक्योरिटी होती है, जो आपके घर में कनेक्शन लगते हैं ब्रॉडबैंड डीएसएल कनेक्शन, राइट, या जो फाइबर बेस्ड कनेक्शन लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज नो सिक्योरिटी, आपके राउटर पे कोई आया तो आपके राउटर एक्सेस कर देगा, देयर इज नो पॉइंट। राउटर पे
जस्ट अगर इंटरनेट राउटर पे आपने काम किया होगा, जो अपनी कंपनी के फायरवॉल्स होती हैं, दे आर वेल प्रोटेक्टेड। उनको ये पता रहता है कि अगर मुझे इस राउटर को एक्सेस करना है तो किस आईपी से एक्सेस हो सकती है और किस आईपी से ब्लॉक हो सकती है। तो आप एसीएल लगाते हो ना अपने वैन राउटर के इंटरफेसेस पे, तो देयर इज अ सिक्योरिटी, स्विच पे भी आप एसीएल लगाते हो। तो ऐसे कैसे कोई एक्सेस कर लेगा? नहीं कर सकता है ना। देयर इज हाई प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी एसीएल सप्लाई ऑन योर राउटर एंड स्विचेस। तो आईएसपी दे डू ऑल थिंग्स, आईएसपी दे ऑल थिंग्स, राइट। मतलब एसीएल से ही सब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फायरवॉल से नहीं हो सकता यहाँ पर कोई भी, मतलब फायरवॉल लगेगी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ फायरवॉल नहीं, आईएसपी आल्सो यूज द फायरवॉल, बट दे प्रोटेक्ट देयर इन नेटवर्क्स, नॉट एंड यूजर नेटवर्क्स। एंड यूजर का ट्रैफिक नहीं प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, वो अपने नेटवर्क, जैसे मेरा आईएसपी का राउटर है, स्विच है, मेरा खुद का सर्वर्स हैं, तो उसको मैं अपने फायरवॉल से प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं एंड यूजर के ट्रैफिक को नहीं ट्रैक करूंगा। दिस इज माय पॉइंट। अब वही सर क्या था, कहाँ लगेगी वो फायरवॉल? अगर जैसे गेटवे राउटर से सारा ट्रैफिक आ रहा है, दूसरे क्या मैंने एयरटेल से कोई लिंक लिया हुआ है, और उसके बाद मेरा गेटवे राउटर है, उसके नीचे फिर ब्रॉडबैंड का मेरा पूरा कनेक्शन है, तो ये गेटवे राउटर और उसके बीच में कहीं लगेगी? सी दो तरह के नेटवर्क होते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग आईएसपी का नेटवर्क का सिक्योरिटी कैसे होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आईएसपी का अपना इन हाउस फायरवॉल हो सकता है, राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वर हो सकते हैं। यू कैन यूज द फायरवॉल, दिस इज द वन थिंग, क्योंकि आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस केस में आपका आर्किटेक्चर हो सकता है कि यू कैन डिप्लॉय द फायरवॉल्स आईएसपी में। बट द सेकेंड थिंग कि जो ब्रॉडबैंड यूजर है उसका ट्रैफिक को आपको सिक्योर करना है, दैट इज नॉट गोइंग टू सिक्योर बाय द योर आईएसपी, वो आपको राउटर में अपने आप करना है। तो अगर आपको नेटवर्क को करना है सिक्योर, दैट इज इक्वल टू एंटरप्राइज, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कवर करने जा रहे हैं, हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। बट वही आप, हाँ, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट ओनली। बट अगर यू आर टॉकिंग अबाउट द एंड पॉइंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आईएसपी इतना, हाँ, तो ये इंटरनल हम बात करें कंपनी वाला, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। एक्चुअली मेरे पास ना अभी फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज के लिए वो आते रहते कॉल, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ना ये मांग रहे हैं कि कोई दो फायरवॉल ज्यादा मांग रहे हैं, मतलब कि कोई सी भी दो कॉम्बिनेशन है, पालो अल्टो FortiGate, पालो अल्टो ASA FortiGate, तो ऐसा क्यों? अब दो फायरवॉल का क्या रोल आ गया? This is like, you know, multi-skill requirement keep coming in the market, so ये चीजें होती रहती हैं, it's normal। और ये भी देखने में आ रहा है कि जैसे कि माइग्रेशन वाला, कि पालो अल्टो टू आपने इसमें माइग्रेशन क्या नहीं किया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करता है तो फिर उसको क्या आंसर देना है? So you just have to understand migration, आपको माइग्रेशन टूल के बारे में पता होना चाहिए। I'll tell क्या क्या माइग्रेशन टूल है और कैसे वो उसमें होता है, जस्ट ब्रीफ यू। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं माइग्रेशन कभी लाइफ में, अगर ASA टू पालो अल्टो, तो आप नहीं बता पाओगे इसको। So you just have to, सर सिक्योरिटी इंजीनियर और पालो अल्टो इंजीनियर में क्या फर्क है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। इफ यू आर डूइंग द पालो अल्टो इंजीनियर, यू विल बिकम द सिक्योरिटी इंजीनियर, सेम थिंग। आप कोई फायरवॉल पढ़ लो, यू विल बिकम द सिक्योरिटी इंजीनियर। ओके, ठीक है। सो मूवी, यस 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 सर एक क्वेश्चन था पूछने के लिए। हाँ बताइए। ये पूछना सही है नहीं? सपोज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हायर किया, तो बोला कि एक फायरवॉल इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर होता है और क्या क्या पूछना वही चाहिए? वही मैं बता रहा हूँ, एक एक करके। अभी इंस्टॉल ही करने वाले हैं फायरवॉल, हम लोग लगाने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट 30 मिनट में आप लोगों को यही बताऊंगा कि हाउ फायरवॉल इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। अभी मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, मैं बताता हूँ अभी। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई विल टेक क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पोर्ट्स होता है, दैट इज अ कंसोल पोर्ट और मैनेजमेंट पोर्ट, ठीक है। सो अब हमारे पास बात आता है कि इफ यू हैव टू कॉन्फ़िगर, जिसको हम डे 0 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं या डे 1 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो इन टर्म ऑफ द लाइक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। तो आपको अगर नया फायरवॉल मिल जाए, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस, और आपको उसको करने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, जो अभी पूछ रहे थे राज जी। सो द प्रीरिक्विजिट इज कि आपके पास एक तो पहले डिवाइस होनी चाहिए, राइट, और इसमें एक पावर होनी चाहिए। दो चीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब द डिवाइस शुड बी इंस्टॉल्ड इन द रैक एंड इट इज कनेक्टेड विद द पावर सोर्स। अगर इसका पावर नहीं है, सो यू कांट डू एनीथिंग। सो इफ इट इज कनेक्टेड विद द पावर सोर्स, पीछे बैकएंड में आपको पावर का मॉड्यूल मिलेगा। सो यू जस्ट हैव टू कनेक्ट दिस डिवाइस विद द पावर। सो यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन दिस डिवाइस। Once you turn on this device, this LED is going to be glow. There would be 3 colors. Either could be the red, either could be the amber, or could be the green.
ठीक है, 3 ही कलर हो सकती हैं। सो अगर ये ग्रीन है दैट मीन्स कि HA स्टेट्स, अलार्म, टेम्परेचर एंड पावर। सो HA हाई एबिलिटी विल कवर लेटर। ग्रीन है मतलब कि HA सही से काम कर रहा है। स्टेट्स मतलब आपके इंटरनल सारे फंक्शंस इट्स ऑल वर्किंग फाइन। अलार्म मींस देयर इज नो अलार्म इफ ग्रीन, सब ग्रीन है तो टेम्परेचर भी आपको नॉर्मल है, पावर भी ओके है, सो यू आर गुड टू गो। सो आपको हमेशा फिजिकली अगर कभी भी कोई फायरवॉल में दिक्कत आ रही है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रबल शूट, यू शुड आस्क टू लोकल साइट इंजीनियर और जो भी लोकल IT इंजीनियर होंगे, बॉस थोड़ा मुझे फायरवॉल के LED के बारे में बता दो कि ऑल सॉलिड ग्रीन्स और कोई एम्बर तो नहीं है, कोई रेड तो नहीं है। अगर वो बोलता है कि रेड है या एम्बर है तो एम्बर इज समथिंग की अलार्मिंग कि आपको कुछ फिक्स करना है, राइट? क्यों एम्बर है? जैसे पावर का एम्बर आ गया दैट मीन्स कि या तो टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट कर रहा हो या वोल्टेज सही नहीं आ रही है या तो पावर सप्लाई कोई आपका दो में से एक फेल हो गया। इस तरह से टेम्परेचर का अगर एम्बर आ गया दैट मीन्स टेम्परेचर आपका हाई हो गया या टेम्परेचर में कुछ कुछ आपका मतलब डिवाइसेस हिट होने लगे। तो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट कि LED के बारे में स्टेटस क्या है, तो वो आपको लोकल साइट से पूछना है। इफ यू फाइंड एवरीथिंग इज ग्रीन सो वी आर गुड टू गो। सो दिस इज द अबाउट द LED। सो पावर देने के बाद अब आपके पास दूसरा काम होता है कि अब ये फायरवॉल बिल्कुल नई होती है। सो ये फायरवॉल इज वेरी न्यू। सो इस फायरवॉल के हमारे पास दो तरह का एक्सेस हम ले सकते हैं। पहला हम एक्सेस ले सकते हैं इसका CLI बेस एक्सेस, CLI एक्सेस। दूसरा इसका होता है GUI एक्सेस। सो CLI एक्सेस कमांड लाइन एक्सेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा हमारा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो जो बेसिकली जो पालो अल्टो फायरवॉल होती है इसको दो तरीके से भी मतलब दोनों तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका CLI एक्सेस लेना है तो इट कैन बी अगेन टू टाइप ऑफ द CLI एक्सेस। या तो इसको रिमोट से ले सकते हो, रिमोट SSH और टेलनेट से। दूसरा कंसोल से। तो कंसोल के लिए यू जस्ट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द फायरवॉल, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यू कैन नॉट टेक द रिमोट कंसोल अनलेस और अंटिल यू हैव द OAB कनेक्शन, आउट ऑफ बैंड कनेक्शन। अगर आपके पास OAB कनेक्शन है, आउट ऑफ बैंड कनेक्शन, देन यू टेक द कंसोल रिमोटली। बट आपको जनरली आपको कंसोल हमेशा यू हैव टू कनेक्ट योर लैपटॉप ऑन कंसोल पोर्ट विद अ सीरियल केबल, जो अभी हम बात कर रहे थे, राइट? तो आपके PC को इस कंसोल जो केबल होता है, राइट, उस कंसोल केबल से आपको इस PC एंड योर लैपटॉप कनेक्ट करोगे। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपके पास एक ब्लैक विंडो स्क्रीन आ जाएगी which I'm going to show you and you will get the firewall access। ठीक है, तो ये आपको कंसोल से करना पड़ेगा। तो कंसोल के थ्रू आप इसका CLI एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको रिमोट लेना है CLI एक्सेस तो आपको टेलनेट एक्सेस करना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ कैसे ये होगा। कंसोल का मतलब आप लोग समझ गए। तो कंसोल भी दो तरीके का होता है, एक आपका RJ45 वाला कंसोल होता है और एक आपका C टाइप, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, इस टाइप का भी कंसोल होता है। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो। आप C टाइप कैन बी यूज और आपका प्रोबेबली RJ45 also can be used। So it's totally depend कि आप किस तरीके से you want to access it। ठीक है, so now it's all about the CLI access via the console। So your उसके लिए भी आपके PC चाहिए, आपके पास कंसोल केबल चाहिए, then only you take the CLI access। अब बात करते हैं कि इसी फायरवॉल का मुझे GUI access लेना है। So how it is going to happen? So for GUI access आपको basically you just have to connect your PC, might be just you want to take the GUI access, right? So आपका ये कनेक्शन आपके PC में आकर थ्रू RJ45 केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। ये RJ45 Cat5 Cat6 जो केबल होते हैं उसके थ्रू कनेक्ट होगा। और यहाँ पे एक हार्ड कोडेड IP होती है जिसकी IP जो इस पोर्ट पे पड़ा होता है वो IP होती है 192.168.1.1। ये IP इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंटरफेस पे हार्ड कोडेड होती है। जब भी आप फायरवॉल खरीदते हो तो सेम सीरीज का IP अपने आप पालो अल्टो फायरवॉल के PC के ऊपर आप जाके दे दो 192.168.1.10 दे दो /24। तो जैसे ही दोगे ये दोनों पिंग होने लगेंगे एंड देन यू विल टेक द GUI एक्सेस। अभी मैं जो करके बताता हूँ अभी आप लोग को। सो ये बात समझ में आ गई कि फायरवॉल दिखती कैसी है, फायरवॉल के डिफरेंट पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट पोर्ट क्यों यूज करते हैं। इट्स फॉर द GUI, कंसोल पोर्ट्स फॉर CLI। दो तरह के कंसोल पोर्ट हो सकते हैं, C टाइप और RJ45। USB पोर्ट बेसिकली आपको USB स्टिक से अगर कुछ iOS कॉपी करना है, कुछ लाइसेंस कॉपी करना है, कुछ भी अगर कॉपी पेस्ट करना है तो यू कैन जस्ट आप फाइल में डालकर डिटेक्ट करके वहां से कॉपी कर सकते हो। सो दैट इज फॉर द USB।
राइट। सो नेक्स्ट स्टेज, लेट मी सी, एक क्वेश्चन है मेरे पास। माय क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बॉक्स, इज माइक्रोसिटी नथिंग एल्स नाउअडेज, क्लाउड टेक्नोलॉजी बूमिंग, इज देयर cloud technology dominating traditional network coming days, significant security scenario? The long story short, Habibul, right? I would say, right, these are the base foundations. Cloud इसी से बना है और यही चीज क्लाउड में यूज होती है। Palo Alto Firewall ही क्लाउड में जाके लगता है, जो हम वर्चुअली यहाँ बनाए हैं ना, यही जाके वहां भी लगता है। So these are like never going to end next 20 to 30 years. Never going to use, means I can say like stop working in the somewhere in the industry. It is always going to be used. और यही फायरवॉल की इमेज जो है ना, जहाँ पे लगा हुआ वर्चुअल, वही वर्चुअल जाकर लगाती है, वो क्लाउड बन जाता है। इवन राउटर स्विच भी क्लाउड वर्चुअली होते हैं, तो वहां भी सब कुछ आपको नेटवर्किंग, बीजीपी, ओएसपी सब चलाने को मिलता है। तो ये आपको हमेशा और हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऐसा खत्म नहीं होने वाला है। सो मूविंग नेक्स्ट, कि मैंने बताया कि आपको इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो इनिशियल जब कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो आई एम मूविंग टू द बुक। मेरे पास दो बुक हैं, एक पैन 9.0 है, एक पैन 10.0 है। सो आई विल गो एंड एक्सप्लेन अबाउट 10.0 क्योंकि लेटेस्ट हमारा है। सो यहाँ पे अगर आप जाते हो, सो यू विल फाइंड दैट कि हमारे पास इस बुक के अंदर परफॉर्म इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज समथिंग गेटिंग स्टार्टेड इन द Palo Alto Firewall। सो जितना भी करिकुलम है ना, जितना भी करिकुलम अगर देखोगे, इट इज डिट्टो फ्रॉम दिस बुक। कि आपको ऐसा कुछ नहीं कि इधर उधर कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। दिस और करिकुलम विच इज गोइंग टू कवर योर PCNSA एंड PCNSE एग्जाम। दैट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज आई एम शोइंग, दे हैविंग ऑल दिस लाइक टॉपिक्स जो मैं आपको दिखा रहा था, और इससे आपको 2 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो इसी में से जो पहला आज हमारा बेबी स्टेप्स है कि हाउ टू परफॉर्म द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तक मैंने ये समझाया आप लोगों को कि हम जब Palo Alto Firewall देखते हैं विजुअलाइज, तो हाउ इट लुक्स लाइक। जब उसको हमें GUI एक्सेस लेना होता है तो हमें मैनेजमेंट इंटरफेस की जरूरत होती है, जिस मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट ये वाली आईपी कॉन्फ़िगर होती है, देखो। और हर एक फायरवॉल का कोई भी फायरवॉल ले लो, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन एंड एडमिन होता है, राइट। किसी भी फायरवॉल की अगर आप लॉगिन करते हो तो बाय डिफॉल्ट यूजर एंड पासवर्ड एडमिन एंड एडमिन होता है। मेरे केस में 9.0 का एडमिन एडमिन है, 10.0 का कुछ दूसरा है, राइट। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट, ओके। उसमें आपको एडमिन नहीं यूज करना है, एडमिन यूजर नेम यूज करना है, पासवर्ड इज हार्ड कोडेड फ्रॉम द बैक एंड। सो आपको नॉर्मली जब भी कनेक्ट करोगे तो आपका अगर फिजिकल फायरवॉल है, VM में होगा तो ये आईपी नहीं होगा, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो हम भी करेंगे। बट अगर फिजिकल होगा तो आईपी आपको हार्ड कोडेड होगा। और किस इंटरफेस पे होगा? दिस इज ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस, दिस इज ऑन योर मैनेजमेंट इंटरफेस। जो फायरवॉल का मैनेजमेंट इंटरफेस में दिखा रहा था अभी, उसी मैनेजमेंट इंटरफेस पे ये पर्टिकुलर आपका होगा। सो इस इंटरफेस पे आईपी हार्ड कोडेड होगी, ये वाले इंटरफेस पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द लैब्स। सबसे पहले जैसे लैब हमारी ऑन है, बट मैं दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। तो आपको एक Palo Alto की इमेज चाहिए, तो देखो 9.0 का ऑप्शन है, 10.0 का भी है, 7.1 का भी है। बट आप लोगों को 9.0 और 10.0 में 7.0 इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर रिक्वायरमेंट। सो दिस इज लाइक, लेट्स सपोज 9.0 इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये एक आपका फायरवॉल हो गया। दूसरा क्या बोला कि मुझे अगर इसकी CLI एक्सेस लेना है तो मुझे कंसोल चाहिए, बट वर्चुअली में हम कंसोल तो लगा नहीं सकते हैं। बट आई विल टेल हाउ द कंसोल इज गोइंग टू हैपन हियर। बट आपको GUI लेना है तो यू जस्ट नीड वन PC, ठीक है। एक मैंने PC ले लिया, एंड PC लेने के बाद जस्ट आई नीड टू कनेक्ट दिस PC टू द फायरवॉल ऑन विच इंटरफेस? मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। सो मैं इस पर्टिकुलर फायरवॉल को मैनेजमेंट इंटरफेस से कॉन्फ़िगर कर दूंगा। सो ये मेरी फायरवॉल हमारी हो गई कॉन्फ़िगर। देन दिस IP विल बी द हार्ड कोडेड हियर, आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड मिलेगा, बट वर्चुअल में आपको करना पड़ेगा। और PC पे आपको इसी सीरीज की कोई दूसरी IP देनी पड़ेगी। और ये आपको बीच में जो केबल है दैट इज RJ45। तो ये आपकी डे 0 लैब हो गई, जिसमें आपको फायरवॉल का आपको एक्सेस लेना है, जिससे आपको फायरवॉल को इनिशियली डैशबोर्ड देखना है, कॉन्फ़िगर करना है कि फायरवॉल दिखती कैसे है। तो इसमें हमारा जो iOS चल रहा है वो 10.0 का चल रहा है, इसमें 9.0 का चल रहा है। तो चलो 10.0 पे विल स्टार्ट। मैं जस्ट बना के दिखा दिया कैसे टोपोलॉजी बनी हुई है। सो इन दिस फायरवॉल अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, क्योंकि वर्चुअली है तो इसमें हम कोई फिजिकल केबल एंड लैब तो PC तो कनेक्ट कर नहीं सकते हम लोग, राइट। सो इफ आई डू द डबल क्लिक,
right? If I do the double click, you will get the console access of this particular firewall. So देखो मेरे को console मिल गया यहाँ पे. So if I maximize it, you will find the console like this way. And if I click on the PC also, you will find this PC this way. So सबसे पहले PC का जो password है, the password of PC is 123. आप लोग नोट करते जाओ, right? It is going to be required. The password of PC 123. So आपको यहाँ जाना है simply, and you just have to put 123. So password of PC is like done. So ये PC खुल गया, right? अगर थोड़ा सा इसका अच्छा व्यू देना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन सही करना है, तो just go there and make it like ये कर दो 1440900 और अच्छा दिखेगा पीसी, तो रेजोल्यूशन इसका सही हो जाएगा. सो कीप चेंजेस. चलेगा, थोड़ा सा पीसी आप लोगों को सही दिखने लगा. अब ये पीसी हो गया, राइट? अब इस पीसी पे अगर आईपी देखोगे तो कोई आईपी नहीं होगा आप लोगों को. सो आईपी कॉन्फ़िग, सो देयर इज नो आईपी. There is APIPA IP address 169. This is APIPA self-assigned IP address. So मुझे इस PC को IP देना है. So how I can give the IP address to this PC? कैसे हम देंगे इसको IP address? So to assign the IP address of this machine, basically we और कौन सा IP देना है? ये भी important है. हमें IP देना है किसी सीरीज का 192.168. कोई भी सीरीज का, मतलब जो भी IP आप दोगे, हार्ड कोडेड अगर Palo Alto खरीदोगे फायरवॉल, मतलब हार्डवेयर खरीदोगे, तो इट इज गोइंग टू हार्ड कोड दिस आईपी एड्रेस. सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप यही यूज करो यहाँ भी, और इसी सीरीज का कोई दूसरा आईपी यहाँ यूज कर लो. सो आई एम गोइंग टू यूज 192.168.1.2 हियर. सो मैं यहाँ नेटवर्क में जाऊंगा. जाने के बाद एडेप्टर सेटिंग्स में गया, एंड दिस एडेप्टर सेटिंग्स आई विल गो हियर एंड प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आईपी दे दूंगा 192.168.1.2 एंड सिंपल मैं ये दे दूंगा. डिफॉल्ट गेटवे आप चाहो तो डालो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट लेट्स यूज दिस वन क्योंकि हमसे फायरवॉल से ही बात करना और किसी से बात नहीं करना है. सो 192.168.1.1 अगर नहीं भी देंगे तो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में इट इज गोइंग टू वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई जस्ट गिव एज ए बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि गेटवे देना अच्छी बात होती है किसी भी डिवाइस को, unless you are in flat layer 2 network. So जैसे मैं IP यहाँ दिया, so if I go there and मैं चेक करता हूँ कि what is IP address, तो देखो आपको इस PC को IP address तो assign हो गया, right? As per your need. आपने ये IP सबनेट मास्क एंड गेटवे असाइन कर दिया. अब ये आपका PC का काम हो गया खत्म. PC जब तक इस फायरवॉल को पिंग नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर IP को, तब तक इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो रिमोटली. तो क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ? लेट मी ट्राई 1.1 को 192.168.1.1. देखो नहीं पिंग हो रहा क्योंकि आईपी हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया Palo Alto फायरवॉल पे, तो कैसे पिंग होगा? और ये वर्चुअल इमेज है, इसमें कोई हार्ड कोडेड है नहीं. फिजिकल में बताया हार्ड कोडेड रहता है. तो क्या करना पड़ेगा? हैव टू गो ऑन द Palo Alto फायरवॉल एंड इसको मुझे लॉग इन करना आता है. एडमिन यूजर नेम, राइट? बिकॉज इट्स अ पैन OS 10, इसका फिक्स पासवर्ड है. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हो. देयर इज अ फिक्स पासवर्ड DAUD 1@123. ये पासवर्ड आपको डालना है यहाँ पे, राइट? तो जब भी आप फायरवॉल स्टार्ट करो, यू जस्ट हैव टू वेट 10 to 15 मिनट. जब भी फायरवॉल आप स्टार्ट करो, कोई भी 9.0 और 10.0, आप 10 मिनट वेट कर लो, तब आपकी फायरवॉल पूरी रेडी होती है. इसके डीमन सिंक्स होते हैं, इसके अपने इंटरनल सिस्टम सिंक होते हैं. देन यू जस्ट हैव टू पुट हियर अपना पासवर्ड. जैसे ही पासवर्ड आप पुट करोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी ओपन इन दिस वे. देखो मैंने डाला एंड इट इज ओपन. ये बता रहा है कि अब आपके फायरवॉल में लॉग इन हो गए हो. तो दिस इज हाउ टू लॉग इन द फायरवॉल. अगर ये 9.0 होता है तो उसका प्रोसेस अलग होता है, मैं मंडे को क्लास में बताऊंगा, ठीक है? बट 10.0 का बिल्कुल आपको सिंपल सा DAUD@123 D कैप्स में यूज करना है, राइट? एंड इट इज गोइंग टू बी लॉग इन. तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आपको पहला कमांड चलाना है यहाँ पे. पहला कमांड टू वेरीफाई व्हाट इज IP एड्रेस अवेलेबल ऑन माई मैनेजमेंट इंटरफेस. इसको चेक करना है कि क्या कोई मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे IP एड्रेस है. So how we are going to verify? So the first thing you have to do here, you just have to run the command show system info. This command system info मतलब कि आपका जो मैनेजमेंट जो भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, फायरवॉल की इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द लाइसेंसिंग, इंक्लूडिंग द आपका वर्जन्स, आपका जो भी मॉडल है फायरवॉल का. लेट मी शो यू.
सो देखो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे आपका होस्ट नेम क्या है, आपको आईपी एड्रेस, देखो आईपी एड्रेस इज समथिंग मैनेजमेंट, इट्स अननोन, इट्स अ नेट मास्क अननोन, डिफॉल्ट गेटवे अननोन, आईपी असाइनमेंट डीएससीपी। देखो मॉडल क्या है आपका, सीरियल नंबर क्या है, इस लाइसेंस, आपको सीरियल नंबर भी यहाँ दिख रहा है आपको, राइट। तो ये आपके जो डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस हैं, ग्लोबल प्रोटेक्ट वगैरह का, वाइल्ड फायर का, ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। बट यू डोंट हैव द आईपी एड्रेस ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका है नहीं। दूसरा तरीका होता है मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी देखने के लिए, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। आप ये कमांड चलाओगे तो देखो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट इंटरफेस दिख रहा है, बट दिस मैनेजमेंट इंटरफेस डजंट हैविंग एनी आईपी एड्रेस, सी ऑल आर ब्लैंक। सो टेक्निकली इस पर्टिकुलर फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस पे हार्ड कोडेड जो आईपी एड्रेस है दैट इज मिसिंग, जो ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है वो मिसिंग है, मतलब ये फिजिकल में ही होता है, वर्चुअल में आपको असाइन करना पड़ता है। तो हाउ इट इज गोइंग टू बी असाइन, हाउ द मैनेजमेंट आईपी इज गोइंग टू असाइन टू दिस फायरवॉल। सो टू असाइन द आईपी एड्रेस यू जस्ट हैव टू गो, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एंड जस्ट हैव टू क्लिक इंटर। सो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, एंटरिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड, देखो ये वाला हम कहाँ चले गए, वी आर इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड नाउ। ये आपका नॉर्मल इनेबल मोड में है जहां पे आप शो कमांड चला सकते हो, बट यू कैन नॉट डू द कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आपको चलाना क्या है कि आपको आईपी आपको यहाँ पे डालना है। सो जब आप यहाँ पे आईपी लिखोगे, आईपी डालने के लिए जो कमांड होती है मैनेजमेंट इंटरफेस पे, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, और यहाँ पे क्या आईपी डालना है 192.168.1.1 और नेट मास्क क्या इसका होगा 255.255.255.0। मैं ये डालूंगा, कमांड तो ले लिया, दिस कमांड हैज बीन टेकन, मैं इसको कमिट करूंगा, एक कमिट भी हो जाएगा, बट स्टिल आईपी इज नॉट गोइंग टू असाइन टू द मैनेजमेंट इंटरफेस। उसका रीजन आई एम गोइंग टू टेल, लेट देम कमिट फर्स्ट। मैं आप लोग दिखा लेता हूँ कि ये कमिट भी हो जाएगा, बट द आईपी इज नॉट गोइंग टू असाइन। सो जब तक आप कमिट नहीं करोगे, कोई भी चेंज कर लो, लाइक विद जुनिपर डिवाइसेस, सिस्को में क्या होता है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन डाला, इट्स कम इन इफेक्ट, बट दिस डिवाइस इज नेवर गोइंग टू कम इन इफेक्ट एनी कॉन्फ़िगरेशन अनटिल और अनलेस वी हैव टू डू द कमिट। आप CLI से करो या GUI से करो, आपको दोनों ही केस में यू हैव टू डू द कमिट। तो कमिट के बाद ही कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव होगी और अप्लाई होगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, वरना ये कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में रहती है। अब कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आई विल कवर लेटर ऑन, ठीक है, बताऊंगा मैं क्या होता है। बट उसको हम बोलते हैं कि अनसेव्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इन पालो अल्टो। तो अभी 98% इट्स कमिटेड, सो जस्ट वेट फॉर 2% मोर, इट्स बिकम द 100%, देन इट इज रेडी टू यूज। So now you see you done 100% सक्सेसफुल कमिटेड। सो आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि आपकी कमिट हो चुकी है। सो अब ये कमिट हो गया, सो क्या मेरे इंटरफेस पे आईपी मिला, लेट्स वेरीफाई। सो इफ आई एम गोइंग हियर शो सिस्टम इन्फो, से स्टिल देयर इज नो आईपी एड्रेस, देयर इज नो आईपी एड्रेस। आप लोग देखो कोई आईपी एड्रेस नहीं है। अगर मैं जाता हूं यहाँ पे, हमने दिया बट स्टिल देयर इज नो आईपी एड्रेस। शो इंटरफेस मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो आईपी कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ, इट इज अ मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया, क्यों हुआ ऐसा। सो देखो जो अभी ये कमांड में चला रहा हूँ, सो सिस्टम इन्फो, दिस कमांड, सो सिस्टम इन्फो, दिस कमांड इज शोइंग होस्ट नेम PA, देयर इज नो IP, नो गेटवे, IP असाइनमेंट इज DSCP। दिखाएं जरा कुछ भी। Sorry guys, till where I was audible, somehow I lost that. आप लोगों ने कहाँ तक सुना? Now audible. कहाँ तक सुना आप लोगों ने? It has been the configuration in IP DSCP, बस इतना ही सुना।
अच्छा DHCP, ओके राइट, सॉरी। सो आई वाज टॉकिंग लाइक कि हमारा DHCP जो है, हमने देखा IP देयर वाज नो IP, बट यहाँ पे IP असाइनमेंट मेथड जो DHCP, सो बिकॉज इट्स अ DHCP, सो ये तब तक आपको IP नहीं फायरवॉल को असाइन होगा जब तक आप इसको स्टैटिक नहीं करोगे। ना कीप विल ट्राई टू रीच टू DHCP सर्वर टू गेट द IP एड्रेस, DHCP सर्वर, देयर इज नो DHCP configured, so it is never ever possible to assign the IP address. So we just have to change this DHCP to static. How it is going to happen? Let me show that. And जैसे ही मैं इसको static करूंगा, जो मैंने configuration commit किया था वो अपने आप ही effect में आ जाएगा। तो इसमें फिर से आपको configuration में जाना पड़ेगा। Let me just go. So go in the configuration, set device config. Sorry, कोई chat कुछ बोल रहा है। Front increase. Okay, let me try. नहीं हो रहा दोस्त। I'll increase the CLI मैं जब इसका पट्टी सेशन लेंगे तो अभी थोड़ा डाइजेस्ट कर लो आप लोग, ठीक है? Sorry for that. So set device config system, right? Type, and here you just have to select the static. So जब तक आप system type change नहीं करोगे, you are not able to like make in effect IP address which you configured. So आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप करना पड़ेगा स्टैटिक। जैसे ही मैं इसको करूंगा स्टैटिक, एंड वंस आई विल डू द कमिट, आपका IP एड्रेस वहां पे असाइन हो जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ये कमिट हो जाएगा, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। Now it's 100%, right? So we are good now. So if I'm going again and try to check show system info, right? तो देखो अब आप लोग, अब यहाँ पे ये IP असाइन हो गया, इसका सबनेट मास्क भी असाइन हो गया, और यहाँ पे असाइनमेंट टाइप स्टैटिक हो गया। तो पहला कमांड कमिट हो गया था, बट इट वाज नॉट कमिंग इन इफेक्ट। तो ऐसा मत घबराना कि भाई मैं कमांड दे दिया एंड इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपका असाइनमेंट तरीका जो था वो स्टैटिक नहीं था, इट वाज डायनेमिक। तो आपको ये चीज चेक करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, सॉरी सर डिस्टर्बिंग। या प्लीज गो अहेड, या प्लीज गो अहेड। यहाँ तो ऐसे दिया, लेकिन रियल सिनेरियो में ये IP एड्रेस कहाँ से मिलेगा? कोई वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होगा। इन रियल सिनेरियो दिस IP विल बी द ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर। आपको सिर्फ अपने PC में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये PC है ना, सिर्फ इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको, इस PC के अंदर करना पड़ेगा सेम सीरीज का IP एड्रेस। रियल सिनेरियो में ये IP ऑलरेडी इस पे हार्ड कोडेड होगा। अभी मैं दिखाऊंगा आगे भी वो कैसे हार्ड कोडेड रहता है। अभी मैं एक सिनेरियो बताऊंगा पैनोरामा में, जब मेरे पैनोरामा होगी ना उसमें हार्ड कोडेड मिलेगा आप लोग को, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? अगर सर ये क्लाउड से पड़ी होगी तो फायरवॉल तब भी ऐसे करना पड़ेगा? क्लाउड जितनी वर्चुअल होंगी, यू जस्ट हैव टू डू द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। अगर वर्चुअल होगी तो जैसे हम अभी कर रहे हैं, हाँ, आपको वर्चुअली आपको मैनेजमेंट IP असाइन करना पड़ेगा। फिजिकल होगी दैट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर हार्ड कोडेड, ठीक है? सो नाउ मेरे पास IP हो गया। अब इसको दूसरा कमांड शो इंटरफेस मैनेजमेंट। सो देखो अब यहाँ पे देखोगे आप, सो यू विल फाइंड दैट कि आपको इसका IP भी है और इसका सबनेट मास्क भी है। कोई गेटवे हमने नहीं दिया, देयर इज नो गेटवे, सो लिव इट द गेटवे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, अभी कहीं जाना नहीं है, बट आगे हमें जरूर चाहिए होगा गेटवे का। सो अभी मेरे इस PC को फायरवॉल पे IP मिल गया। तो अब मेरा, अब आप लोग नोटिस करो तो ये PC का रेंज और ये फायरवॉल का मैनेजमेंट इंटरफेस का रेंज दोनों सेम है, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद RJ45। तो क्या मैं इस PC से इस फायरवॉल को पिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर पाऊंगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं आप?
कर सकते हैं सर। ऑल इन अग्रीमेंट, और कोई ऐसा है कि जो बोलता है कि नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कत और आ सकती है? नहीं कर सकते सर। कर सकते हैं। थैंक यू। सो बेसिकली लेट मी ट्राई इट। सो अभी तक मैं कोशिश कर रहा था, इट वाज नॉट रीचेबल, बट अब मैं इसको पिंग करता हूं और मैं आप पे मार के देखो, इट्स अ पिंगेबल। So the moment you able to ping, the moment you able to ping, you are good to go and try to take the GUI access of the firewall. आप अब CLI भी ले सकते हो, अगर यहाँ पे पट्टी सेशन इंस्टॉल है आपका, कर लिया आपने, तो अगर आपको टेलनेट एसएच करना है तो आप इससे भी कर सकते हो। 192.168.1.1 को करोगे, यू विल फाइंड द, देखो यहाँ से आपका रिमोट एक्सेस वाया द पट्टी सेशन मिल गया। अब आपको ये आपका रिमोट एक्सेस सेम चीज है आपका। सो यहाँ पे आपका फायरवॉल का CLI एक्सेस मिल गया। इस तरह से पट्टी सेशन होना चाहिए, आपका IP रिचेबल होना चाहिए। एंड शो, अभी हमारा वो जो ऊपर दिख रहा था वो हमारा कंसोल था, बट दिस इज द रिमोट एक्सेस। और देखो यहाँ पे सारा कमांड चल रहा है आपका, सेम चीज। तो आपको GUI लेना है तो कैसे लोगे? सो फॉर GUI यू जस्ट हैव टू ओपन ईदर एनी ऑफ द ब्राउजर्स, जो भी ब्राउजर है, क्रोम है आपके पास, या फायरफॉक्स है, या कोई एज है, कुछ और ओपेरा है, कुछ भी है। एंड आपको जाने के बाद आपको ब्राउजर में ये IP को टाइप करना है बाय राइटिंग https://192.168.1.1 एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर। थोड़ी देर वेट करो। सो आपको यहाँ कुछ नॉर्मल वार्निंग मिल रहा है, यू विल गेटिंग द वार्निंग दिस इज नॉट सिक्योर कनेक्शन, बिकॉज ये फायरवॉल की एक सर्टिफिकेट होती है, इसको सिक्योर करने के लिए SSL विद सर्टिफिकेट होता है, जो इट्स नॉर्मल, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनीथिंग, ओनली इसका मैनेजमेंट इंटरफेस एक तरह से वार्निंग है कि आप इसको सिक्योर कर लो ताकि कोई इस पे अटैक ना हो। सो आपके प्रोडक्शन में ये मिलेगा, बट हमारे लिए लैब है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट। सो आप जाके यहाँ पे प्रोसीड विद अनसेव करो, इस पे क्लिक करके, एंड once you do that you'll find the dashboard. If it is yellow, that is your PAN OS 10.0. If it is a combination of that, this color like blue or gray or white, like this kind of the interface, I'll show you later. This is the 9.0, 8.0, 7.0. So always 10.0 come with the yellow combination, but below that 10.0 OS version or PAN OS version, they come in this particular yellow, blue, green color of combination. So again you have to use, यहाँ पे आपको जाना है admin, और जो मैंने पासवर्ड बताया था आपको पासवर्ड यूज करना है, then log. So आप यहाँ पे login कर लिए. So now you will see the dashboard of the Palo Alto Firewall. So you can see now this is the dashboard of the Palo Alto Firewall. Yeah, and you can see हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि देयर इज अ डैशबोर्ड ऑप्शन, हमारे पास ACC एप्लीकेशन कमांड सेंटर, वी हैविंग द मॉनिटर टैब, वी हैविंग अ पॉलिसीज, वी हैविंग अ ऑब्जेक्ट्स, वी हैविंग अ नेटवर्क्स, वी हैविंग अ डिवाइसेस। बट विल कवर वन बाय वन ड्यूरिंग अपकमिंग सेशंस कि इसमें क्या होता है, क्या मतलब होता है। बट फॉर टाइम बिंग यू सी द डैशबोर्ड। आप इस डैशबोर्ड पर देख रहे हो तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फायरवॉल आपकी किससे लॉगिन है? एडमिन से लॉगिन है, एडमिन यूजर से। तो जो जो यूजर फायरवॉल में लॉगिन होते हैं उसको देख सकते हो कौन से यूजर से लॉगिन है, किस IP से लॉगिन है। देखो ये भी IP से लॉगिन है और ये भी IP से लॉगिन है। ये आपका CLI लॉगिन है, एक इसमें आपका कंसोल वेब हो गया, ये कंसोल कनेक्शन हो गया, और ये आपका CLI कनेक्शन रिमोट वाला हो गया। और सॉरी ये एक कंसोल ये वाला हो गया आपका, सॉरी फॉर दैट, ये आपका CLI जैसे किया, और ये आपका वेब जो आपका GUI एक्सेस हो गया, वेब इज GUI एक्सेस। यहाँ कंसोल देखो, और ये आपका CLI हो गया, और ये आपका जो अभी GUI हमने एक्सेस किया, ये GUI एक्सेस हो गया। किस टाइम पे एक्सेस हुआ, ये सारा डिटेल एंड ऑल आप यहाँ देख सकते हो।
फिर इस तरीके से कौन सा डिवाइस है फायरवॉल का, नेम क्या है, इसकी आईपी क्या है, मैनेजमेंट आईपी क्या है, राइट, इसके मैक एड्रेस क्या है, मॉडल क्या है, सीरियल नंबर क्या है, राइट, कितने सीरीज का वीएम है, तो वीएम 50 है, राइट, कितने कैपेसिटी है, 5.5 GB कैपेसिटी है, मोड क्या है, केवीएम है, सॉफ्टवेयर वर्जन देखो 10.0.3 है, इसमें ग्लोबल प्रोटेक्ट 0.0.0 है, इसमें यूआरएल फिल्टरिंग, टाइम, वर्जन, सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। सो विल डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। यहाँ पे देखो एडमिन से लॉगिन होती है दिखा रहा, आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, लास्ट लॉगिन सारी चीज बता रहा है। यहाँ पे टास्क में जाओगे तो यहाँ पे कोई टास्क रन कर रहा है, ऑटो कमिट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, बट विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या होता है। बट द एजेंडा वाज फॉर टुडे क्लास कि हाउ टू टेक द जीयूआई एक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर फायरवॉल, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एजेंडा। अगर आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर हो और पालो आल्टो इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पालो आल्टो फायरवॉल। सो आपके पास ये बुक में सारी स्टेप्स लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे कनेक्ट द RJ45 Ethernet cable from your PC to the management port and browse this IP address। और देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, you may need to change the IP address of your computer from this network such as 192.168.1.2। ये सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। सो यू हैव टू रीड बुक वेरी केयरफुली, यू हैव टू फॉलो मी एवरी टाइम। और कैसे कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन आगे हम बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है, पासवर्ड यूजर हम कैसे चेंज करते हैं, तो बाकी चीजें इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिक एंड डीएसपी मैंने बताया CLI से, बट अगर जीयूआई से भी चेंज करना है आपको तो आप जीयूआई से भी कर सकते हो। कैसे करोगे जीयूआई से, अगर आपको किसी इंटरफेस पे आपको जाकर असाइन करना है डीएससीपी मैनेजमेंट आईपी या फिर स्टैटिक करना है तो यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। तो आपको जाना है यहाँ पे डिवाइसेस में, सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस पे जाना है, जो मैंने CLI से किया कि कैसे डीएससीपी से स्टैटिक किया उसको आप जीयूआई से भी कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, एक बार रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे गया and then you click on the management interface। so यहाँ पे देखो DSCP कर दूंगा मैं and then commit, then again it become the DSCP। so this is the day 1 how to configure the lab। okay, कैसे मैं day 0 configuration करूंगा, right, उसके बारे में। so I'll recommend everyone to do this lab, right। आप लोग एक्सेस ले लो अपना अपना, right, and you just have to do these labs and try to understand कि किस तरीके से configuration आपका day 0 की हो रही है। अब बताओ any question anyone have, right, because today agenda to just configure the initial configuration we have done। इसमें कौन सा इमेज यूज होता है पालो अल्टो में? iOS जैसे राउटर में होता है, iOS XC SD-WAN में होता है, इसमें इसको बोलते हैं पैन ओएस बोलते हैं, पैन ओएस। अच्छा, आपने कई बार नाम लिया है इसका एक्चुअली। हाँ हाँ, 8.0 होगा, 9.0 सीरीज का होगा, 10.0 सीरीज का होगा, ठीक है, यही 3 होंगे जो आपको मैक्सिमम आप या तो 9 मिलेगा या तो 10 मिलेगा। बेस्ड पे मतलब लिनक्स पे ही बेस्ड है ये आपको जेसन फॉर्मेटिंग में, ये लिनक्स फॉर्मेटिंग में कई सारे हैं, तो आपको बेसिकली आजकल तो यांग में भी आते हैं इमेज, लिनक्स में भी आते हैं। सो तो ये डिपेंड कि मतलब कि डेवलपर ने कैसे बनाया है, दैट लेवल विजिबिलिटी हमारे पास नहीं है, बट अगर आप सर्च करो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक ठीक सर, ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? It is actual class today. Actually, this is the actual class only. But today there are many people demanded to have that access we have given. But this is the last access we have. Monday onward we create the permanent Zoom, and this is only for the registered user is going to use this class. Okay. Do we have access to this lab? क्या? Sorry. कितनी देर की क्लास होगी? The class is going to happen from 8 to 9:30. IST, 8 PM to 9:30 IST। इनिशियली थोड़ा आप लोग 1-1.25 घंटे की क्लास होगा, क्योंकि इनिशियली थोड़ा मैं स्लो जाता हूँ ताकि आप लोगों को डाइजेस्ट करना होगा। एक साथ मैं सब कुछ बता दूंगा तो यू गाइस नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट, बट हाँ विल फिक्स एटलीस्ट 1.5 घंटा में पढ़ाई करनी है। आगे चल के 2-4-5 क्लासेस हो जाएंगे तो फिर यू विल हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि शुरू में थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो जाता है। अभी तो लैब मैंने कराया, बट व्हेन यू स्टार्ट द क्लासेस हमारे पास ये सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, कंप्लीट थ्योरी, फ्लो लॉजिक जो हम पढ़ेंगे इट्स कंप्लीट आपका, इसमें भी आपको पूरी
पैकेट फ्लो के बारे में समझना है, आई बिलीव इट्स ओपन समवेयर, नहीं ओपन है, लेट मी जस्ट शो यू। सो आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सर इसको एज ए राउटर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, राउटर की तरह भी यूज करेंगे, राउटिंग भी इसमें चलाएंगे, बीजीपी चलाएंगे, ओएसपीएफ चलाएंगे, स्टैटिक राउटिंग चलाएंगे, रिप भी मीन चला सर देंगे अगर अगर आप लोग। पालो अल्टो यूज कर रहे हैं तो राउटर की जरूरत नहीं है नहीं किसी कोई साइट जरूरत, पे? कुछ भी जरूरत नहीं, मेनी कस्टमर आर यूजिंग द पालो अल्टो, राउटर यूज ही नहीं करते हैं। ओके ओके। हाँ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पालो अल्टो फायरवॉल, ये बहुत पैसा बचाता है। राइट। So, what's the registration process? Do I need to register for the classes or? Yes, you have to register the classes. You have to register. Okay, I don't have any specific link for the registration. Okay, let me share one of the contact you can reach out. Okay. Or through the WhatsApp, I can get the link from you. Yeah. Just paste the number. Yeah, you can just reach out to counselor. Yeah, I was speaking to you yesterday. Yes. Please, yeah, reach out. Okay. Yeah. Any other question, guys? Anyone having anything to ask? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए आनंद जी। Palo Alto का बस ओएस डाल दिया तो वो चलने लगता है, नॉर्मल यूज कैन बी डन, या फिर उसको चलने के लिए लाइसेंस लगता ही है? नहीं, आपको वीएम चाहिए, बिना लाइसेंस के भी आप 95% फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। 5% फीचर यू कैन नॉट एक्सप्लोर, यू नीड अ लाइसेंस। आपको मिल जाएगा अनलाइसेंस वीएम, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको चाहिए होगा तो। एंड यू कैन यूज ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन। जानना था क्या रियल सिनेरियो पे जानना था। रियल सिनेरियो में? हाँ, रियल सिनेरियो में आप यूज करो, भी अगर बट मैं हार्डवेयर यूज करूँ खरीदूं तो साथ में मुझे लाइसेंस लगेगा ही? अगर आपको सारे फीचर एक्सप्लोर करना है तो 100% आपको, मतलब फुल फ्लैश यूज करना है तो। अगर आपको नॉर्मल राउटिंग करनी है, पॉलिसी बनानी है, नेट करना है, नॉर्मल कुछ ब्लॉकिंग करनी है, एप्लीकेशन है, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट इफ यू वांट टू गो लाइक कंटेंट आईडी, इस मॉड्यूल पे बताता हूँ क्या क्या नहीं चलेगा आपको उस पे। ये कंटेंट आईडी के जो फीचर है ना, यूआरएल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, ये सब आप नहीं कर पाओगे। डॉस भी कर लोगे आप, फाइल्ड फायर आपका नहीं चलेगा, इसका भी लाइसेंस चाहिए होता है, अलग से चाहिए होता है, ठीक है। बाकी डिक्रिप्शन पे आपका चल जाएगा, बट कई बार ये दिक्कत करता है, बट चल जाएगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू वर्क। तो कुछ फीचर्स नहीं चलेंगे, बाकी 95% फीचर यू कैन डू। 5% चीजें हैं जो नहीं चलेंगे आपको, बाकी एचए वचे सब चल जाएगा। आपके एचए लोड प्रोटेक्ट भी चल जाएगा, आईपी सेक्टर बन जाएगी, यूजर आईडी भी चल जाएगा आपका, सब हो जाएगा। Thank you. Welcome. Sir, any badge for the weekend or that's all? No, for there is weekdays? no for time being weekends, but we can plan any time. We can discuss offline if required, okay? But for time being, this batch is like started for the weekdays only. Okay, sure. Thank you. One quick question, sir. Yes, Raj. अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि प्रीरिक्विजिशन क्या है फायरवॉल इंस्टॉलेशन के लिए, बोला तो कैसे रिप्लाई? There is only one prerequisite for the any security engineer, like not only the Palo Alto Firewall, yeah, checkpoint or the FortiGate. Basic networking. Basic networking is a prerequisite. अगर आपको आता है, that means CCNA level knowledge आपका है, you can go with any firewalls, any proxy solutions. क्वेश्चन ये था कि अगर आपको पालो अल्टो फायरवॉल डिवाइस दे दिया तो आप इंस्टॉल करने के लिए प्रीरिक्विजिशन क्या है, बोला था। अच्छा, प्रीरिक्विजिट क्या है? तो प्रीरिक्विजिट ये है इंस्टॉल करने के लिए कि आपको पास बताया ना कि आपको पालो अल्टो की डिवाइस होनी चाहिए, फिर उसमें उस डिवाइस के अंदर पावर होनी चाहिए, पावर कनेक्ट होना चाहिए, फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, जैसे आप उसे कंसोल ले लो, जैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जब तक आप इसे नहीं करोगे, देन हाउ यू टेक द GUI एक्सेस। दीज आर द प्रीरिक्विजिट। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं ना हम, ये वाले जो बता रहा था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें तो पावर और कंसोल के बारे में नहीं लिखा है, बट इट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल कि आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर द प्रीरिक्विजिट, कि साइड पे आपका हार्डवेयर होना चाहिए, आपको वहाँ पे रैक में इंस्टॉल होना चाहिए, उसमें पावर केबल कनेक्ट होना चाहिए, पावर सोर्स ऑन होना चाहिए, आपके पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कंसोल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, देन आपको उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना है। बस इतना करो, आपका फायरवॉल लाइव हो जाएगा। सर जो इंटरफेस का जो जितना भी DMG जितना भी IP एड्रेस यूज होता है इंटरफेस में, वो कौन से कैसे मिलेगा? वो नेटवर्क इंजीनियर से देगा या हम लोग? नहीं, वी हैव टू लर्न ना एवरीथिंग, विल अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, जोन क्या होते हैं, इंटरफेस पे IP देते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, व्हाट डज मीन द लेयर 2 लेयर 3, दैट वी हैव टू कॉन्फ़िगर। Nobody is going to give you. You have to make your low level design, low level LLD, right?
we have two things. One is the HLD and another is LLD. So जब आप कोई साइट डिजाइन करते हो तो how interface is going to configure, that everything is going to write in a your LLD. नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो आईपी एड्रेस है वो तो ऑन यूजेबल आईपी एड्रेस चाहिए ना उस टाइम में जो यूज कर रहा है, तो उस टाइम में नेटवर्क इंजीनियर से बात करना पड़ेगा या कैसा होता है रियल सिनेरियो में? रियल सिनेरियो में आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं लो लेवल डिजाइन। उस डिजाइन में सब कुछ लिखा रहता है कि आपका मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी क्या होगा, आपके लैन इंटरफेस का आईपी क्या होगा, आपके वैन इंटरफेस का आईपी क्या होगा, आपके जो डीएमजी स्विच से कनेक्ट हो रहा है उसका आईपी क्या होगा। एवरीथिंग इज रिटन डॉक्यूमेंट। सो वो आपको एलएलडी का डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपका डिजाइनर और आर्किटेक्ट बना कर देता है। देन यू कैन गोइंग टू कॉन्फ़िगर। ठीक है राज? तो ये समथिंग आपको ऐसे इसमें सर ओनली एलएलडी में ओनली डिजाइनिंग होता है या उसके कमांड्स लाइन की वो भी इसमें मेंशन करता है वो आर्किटेक्ट? देखो थोड़ा सा आप होता है, देखो हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, एचएलडी एंड एलएलडी। कई बार इंटरव्यू पूछते हैं कि डिजाइन रोल पे आते हो आप तो एचएलडी एलएलडी में क्या होता है? तो एचएलडी इज अ हाई लेवल डिजाइन जिसमें आपका एक एक ड्राइंग और एक ड्राइंग होती है जिसके अंदर लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं, राइट? और उसके कुछ पैरामीटर्स कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं कि क्या क्या होना है और कैसे कैसे होना है, राइट? So this is the high level things, you'll get that. But when you talk the lower level design, you'll get the full configuration, right? This document full configuration step by step क्या करना है with interface IP assignment and connected port, जैसे gig port है या इथरनेट पोर्ट है, ये सारे डिटेल्स भी होते हैं। मतलब हर एक चीज, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, इंटरफेस के आईपी एड्रेस, पोर्ट की आईडी, आपकी फुल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज गोइंग टू कॉन्फ़िगर स्टेप बाय स्टेप। लो लेवल डिजाइन में कॉन्फ़िगर होता है, मतलब आपको लिखा जाता है। तो लो लेवल डिजाइन इज द बाइबल ऑफ द एनी नेटवर्क इंजीनियर, आप ये बोल सकते हो। इट इज गोइंग टू कंटेन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू जस्ट ट्रबल शूट द नेटवर्क, टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। जैसे आपने आज कोई साइट डिजाइन कर दी, कल के डेट में फायरवॉल में प्रॉब्लम आ गया, उसको नया आपको कॉन्फ़िगर करना, तो कैसे करोगे? कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास ना, और वो वर्जन आपके हमेशा अपडेट होते रहते हैं। कोई भी चेंज होता है आपके नेटवर्क में तो आपके एलएलडी अपडेट हो जाती है, वर्जन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। गॉट माय पॉइंट और स्टिल नॉट? जी सर एचएलडी आपने बताया ना, थोड़ी वॉइस आपकी आने रही थी। मैं दोबारा हाँ, HLD इज लाइक समथिंग हाई लेवल डिजाइन जिसके अंदर आपका लॉजिकल डायग्राम्स होता है, बट नॉट वेरी लो लेवल, हाई लेवल। जैसे ऐसा ड्राइंग होगा, ऐसा आर्किटेक्चर होगा, इस तरीके से इसमें इस तरीके के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, तो बहुत हाई लेवल होते हैं। जैसे इनिशियली बिडिंग में जाते हैं ना, जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा हमारा आपका नेटवर्क दिखेगा। तो आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, दे एक्सप्लेन टू द योर मैनेजमेंट। जब उनको समझ में आता है देन दे गो फॉर द लो लेवल डिजाइन जिसके अंदर एक एक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी। तो हाई लेवल आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा आपको, हाई लेवल में पोर्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हाई लेवल में बहुत डिटेल्ड डायग्राम नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी और डिटेल्ड स्टेप्स नहीं होंगे, बट लो लेवल में सारा चीज होगा। एक क्वेश्चन होता है, प्रॉक्सी जो आप कहते हैं, प्रॉक्सी का क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में? जो प्रॉक्सी हम डालते हैं लैपटॉप में ना, देखो प्रॉक्सी देखो हमारे पास प्रॉक्सी जो होता है, प्रॉक्सी का मतलब ही होता है कि जैसे इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग इन द कॉलेज, राइट? सो कई बार आपके टीचर या मैम आपकी अटेंडेंस लेती थे, तो यू जस्ट आपके फ्रेंड क्लास में नहीं है फिर भी आपने उसको बोल दिया कि यस मैम आई एम प्रेजेंट। So you did the proxy thing, मतलब on behalf of someone you're doing something, right? So proxy something कि like कि आपका जो, जैसे आपको इंटरनेट पे जाना है आपके पीसी को, so इंटरनेट पे जाना है, so डायरेक्टली आपके पीसी से ट्रैफिक निकला आपके फायरवॉल पे आना चाहिए, राइट? फायरवॉल से आपका नेट होकर ये इंटरनेट पे जाना चाहिए, राइट? So this is something, ये ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। बट आपके इसके पीछे एक पीसी, मान के चलो ये पीसी आपका है, so this is your पीसी। अब इसका दूसरा फ्लो क्या होगा, सॉरी मतलब हाँ मान के चलो कि ये इस तरीके से पीसी से निकला फायरवॉल पे गया, ठीक है? दूसरा फ्लो क्या आपका होगा कि आपका पीसी से निकला ट्रैफिक, राइट, और ये सीधे प्रॉक्सी पे चला गया, राइट? प्रॉक्सी सर्वर पे चला गया, एंड प्रॉक्सी देयर इज नो नेट हैपनिंग एंड प्रॉक्सी इज क्रिएटिंग अ कनेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ लाइक यू टू द इंटरनेट।
तो बेसिकली आपका प्रॉक्सी मतलब कि आपका प्रॉक्सी पूरे ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर लेती है और ऑन बिहाफ ऑफ यू दे आर गोइंग टू मेक अ कनेक्शन टू द google.com। यहाँ पे क्या हो रहा था, कंप्लीट नेटवर्क के थ्रू, जो बीच में स्विच भी आ सकता है, मान के चलो ये स्विच इंटरनेट की जगह, स्विच पे गया पैकेट, स्विच से फायरवॉल पे, फायरवॉल इसको नेट करेगी देन इंटरनेट पे। यहाँ पे ना नेट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सीधे आपने प्रॉक्सी भेजा, प्रॉक्सी इज मेकिंग द वेब कनेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ यू, और वो अपने हिसाब से जब आपका पीसी का एड्रेस आएगा इसको स्ट्रिप आउट कर देगा और अपना एड्रेस लगा के इंटरनेट भेजेगा। जब रिटर्न आएगा ट्रैफिक तो आपको ओरिजिनल एड्रेस पे रिडायरेक्ट कर देगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ द प्रॉक्सी। रिस्की है, मतलब थोड़ा सा ये रिस्की है, मतलब अगर हम डायरेक्टली विदाउट सिक्योरिटी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉक्सी हैविंग ऑल सिक्योरिटी, इवन द फायरवॉल, मोर देन फायरवॉल सिक्योरिटी यू हैव इन द प्रॉक्सी। आज के लिए यही फ्यूचर है, फायरवॉल ज्यादा इसका यूज है, राइट। सर एक चीज पूछना था मुझे। जैसे सर जीएनएस पे हम वायर सार्क यूज करते हैं और सभी हेडर को देखते हैं, टाइप फील्ड देखते हैं, प्रोटोकॉल नंबर देखते हैं, तो क्या ईवीएनजी में भी हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे लेयर के थ्रू ये फ्लो कर रहा है पैकेट? अगर हम एक पिंग रिस्पांस देते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट को, तो उसका वायर सार्क के थ्रू कैसे देख सकते हैं पूरा एक एक हेडर? कुछ नहीं, you just have to install the EVNG and that EVNG should have the client pack installed in your PC। अपने PC में client pack install होना चाहिए और इसमें आपका वायरसार्क सपोर्ट करता है, बट उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, वो लेना पड़ेगा आपको। देन यू कैन विजुअलाइज दैट आल्सो। एक तरीका तो ये हो गया, इसके इंटरफेस को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको देखना है तो पैकेट ट्रेसर यूज कर लो, उसमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। तीसरा तरीका है, जस्ट आप इसमें वायरसार्क इंस्टॉल कर दो इस पीसी में और जो भी कनेक्शन इनिशिएट करोगे सारा कैप्चर हो जाएगा। चौथा तरीका, पालो अल्टो में पैकेट कैप्चर लगा दो, ठीक है, यहाँ से पीकेएफ फाइल मिल जाएगा जो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, और वहां से आप उसको। दूसरा सर लॉक्स, जैसे जो चीजें मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पालो अल्टो के डिवाइस में, उसके टर्मिनल मॉनिटर के थ्रू मैं तो नेटवर्क में कर लेता हूँ, जैसे कि उसके लॉक्स दिखते हैं, लेकिन पालो अल्टो में कैसे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो चीजें लॉक्स दिखने लगे जैसे जैसे मैं कमिट करते जाऊं? कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जो करोगे कॉन्फ़िगरेशन आपको सारा लॉग्स यहाँ बन जाएगा अपने आप ही। ये कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, अपने आप ही बन जाएगा। CLI मोड पे सर दिख सकता है? एक मिनट, हाँ देखो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन सारे किए ना, देखो सारे लॉग्स हैं मेरे पास कि मैंने क्या क्या किया है, देख रहे हो, ये सारे से दिख जाएंगे, इवन CLI में आपको दिख जाएगा। तो ये आपके पास इनबिल्ट फीचर होते हैं कि आपने किस टाइम पे क्या क्या किस आईडी से किया और लॉग्स बन जाते हैं ऑटोमेटिक। ओके ओके, ठीक है सर। मुझे अभी तक ई बुक नहीं मिला है किसी चीज का, और बहुत ही कम फाइल्स हैं मेरे पास पिछले क्लास के। मिल जाएगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिल जाएगा इस वीकेंड में मिल जाएगा। सैटरडे संडे कल था तो मैं पूरा यूटिलाइज कर कोई लेता बात टाइम, नहीं, इसलिए मैं कह रहा था। अभी डलवाता हूँ, ठीक है, रात में डलवाता हूँ, ठीक है, नाइट में डलवाता हूँ आपको, ठीक है, ई बुक्स मिल जाएगा आपको। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, एनीवन हैविंग एनीथिंग? Okay, so in that case, I conclude as a no, and I wish you happy weekend for everyone. ठीक है, and I think US में जो लोग हैं उनके लिए happy morning. Saturday हो चुका है, Friday ऑलरेडी है US में भी। राज and Annie, I believe, और कौन है? It's morning. Friday morning. Friday morning. Okay, Morning, so I believe 11. you guys have to, Yeah. walk us also from. Okay, guys. Anyhow, it's a nice to have all discussion. See you again on the Monday, right? And have a great day, great evening. Okay. Thank you so much. Bye bye. Take care. Good night, everyone. Thank you. All right. So just let me share my screen. Okay. So I know कि आज एक हमारा important IPL का फाइनल है, so there is less participants, but no worry, कुछ देर हम क्लासेस करते हैं and I will stop the session. आप लोग मैच भी enjoy करना। So it was a plan. Sir. Hello, sir. Hello.
I'm just asking what time is the match, the final? It is going to be start, I believe, on 7:30, if I'm not wrong. Okay. So I'm not that interested in cricket. I'm also not much interested, but I just realized today is the it should be yesterday, but due to rain it was cancelled, and today I'm having a final. Okay. All right, so no problem. Let's start. All right. So आज का जो discussion है about the Palo Alto Firewall, right? So welcome you all in the GuiNet technologies. And as usual, आप लोगों को जैसे पता है कि आज हमारा टॉपिक है about the Palo Alto Firewall, stateful versus stateless firewall, right? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, सो पीपल विल आस्क कि भाई स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है, स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल तो सब जानते हैं क्योंकि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फायरवॉल हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि फायरवॉल क्या होती है, कैसे काम करती है, फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। बट अगर उससे एक स्टेप अगर आगे जाते हो तो पीपल स्टार्ट आस्किंग अबाउट द मोर क्वेश्चंस अबाउट द फायरवॉल्स। तो उसमें से एक बहुत ही कॉमन और मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क इन द इंटरव्यू, व्हाट इज अ स्टेटफुल फायरवॉल एंड व्हाट इज अ स्टेटलेस फायरवॉल, राइट? तो आज मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे चलती हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और आप लोग को जो भी क्वेरी होगा जस्ट लेट मी नो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं आप लोग को बहुत ही लेमन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा लैब भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं जरूरत पड़े तो मैं दिखा सकूं कि लैब में क्या है कैसे है। बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट फिर भी लेट्स ओपन इट। तो ओके, सो हमारी पॉलो आउट ऑफ एक मैं फायरवॉल किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, जस्ट इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि इफ रिक्वायर्ड विल टेक द एक्सेस। ठीक है, तो बहुत सारी लैब्स हमारे पास हैं जो हम थ्रू आउट द सेशन करेंगे क्योंकि ये पूरी कंप्लीट लाइव ट्रेनिंग विद द लैब 24/7 लैब्स आप लोग एक्सेस मिलेगा जिसमें सारे लैब आप कर सकते हो जितनी भी हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं। सो कोर्स कंटेंट इट्स अ बिग कोर्स कंटेंट, कुछ छोटा नहीं है क्योंकि इट इज गोइंग टू कवर PCS, PCA NSC एंड PC NSA, बोथ कोर्स इज गोइंग टू बी कवर्ड। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज डिस्कशन करेंगे, जैसे हमारे टोटल 12 मॉड्यूल हैं इसके अंदर टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा सिंगल पास आर्किटेक्चर विद फ्लो लॉजिक क्या होता है। हम बात करेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल बेबी स्टेप्स। जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं यही करके दिखाऊंगा कि अगर आपके पास नया बिल्कुल ब्रांड न्यू फायरवॉल है, सो हाउ यू कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप, और आपको क्या क्या प्रीरिक्विजिट अपने दिमाग में रखना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको अगर राइट स्टेप्स नहीं पता है, राइट प्रीरिक्विजिट नहीं पता है, तो यू विल मेक सम मिस्टेक और माइट बी द मेजर मिस्टेक्स व्हिच लीड टू आउटेज फॉर योर कंपनी और माइट बी द टाइम भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट होगा इन टर्म ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग द फायरवॉल्स। ठीक है, लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन प्रोसेस, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर के अकाउंट्स हम बना सकते हैं, राइट? किस तरीके से हम अपने फायरवॉल के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? सिक्योरिटी जोन्स क्या होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 इंटरफेस क्या होते हैं, वर्चुअल वायर आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, इंटरफेस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, टैप मोड क्या होता है। सो ये सारी चीजें जो आपको नई नई चीजें हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मोर इन डिटेल, नॉट ओनली डिस्कशन, इट्स जस्ट मोर अबाउट द लैब्स। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है इट्स मोर फोकस ऑन द लैब्स, क्योंकि आज के डेट में थ्योरी से ज्यादा इवन कोई भी टेक्नोलॉजीज, नॉट आज की डेट में, कभी भी आप किसी चीज की बात करते हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हो, दे पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड अबाउट द थ्योरी, दे इंटरेस्टेड इन थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट कितने अच्छे तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो प्रैक्टिकली, वो मेजर इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकली ही काम करना, आपको फायरवॉल पे काम करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे फायरवॉल के इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, आपको सब इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे DHCP IP असाइन करनी पड़ेगी, आपको जोन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्या मतलब होते हैं, क्यों डिजाइन किया गया है, राइट? आपको वर्चुअल राउटर की जरूरत क्यों होती है, राउटिंग कैसे होता है वर्चुअल राउटर के अंदर, DHCP से कैसे IP मिलता है, कैसे हम पालो अल्टो फायरवॉल को एज ए DHCP सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे मैं पालो अल्टो को एज ए DHCP रिले एजेंट की तरह कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मेरा DHCP कहीं एक्सटर्नली होस्टेड है। तो ये सारी चीजें हम लाइव करके देखेंगे ड्यूरिंग द अपकमिंग बैचेस, जो भी हमारा अपकमिंग सेशंस होगा उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे एंड विल डू द प्रैक्टिकल।
फिर हम बात करते हैं कि हम सिक्योरिटी, जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी नेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है, क्या हमारा सोर्स नेट होता है, डेस्टिनेशन नेट होता है, यूटर्न नेट होता है, डुअल नेट होता है, इन सारों का हम प्रैक्टिकली करेंगे। पॉलिसी को कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे उसको सीक्वेंस में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैसे उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हर एक पॉलिसी के अंदर बहुत ब्रॉडर फील्ड होता है, हर एक पैकेट के हिसाब से लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 एंड कंटेंट, यूजर आईडी, और भी बहुत सारे एडवांस यूआरएल फिल्टरिंग, आपके कोई भी सर्विसेज, उन सब के बेसिस पे किस तरीके से हम पॉलिसी को मॉडिफाई करते हैं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे हायरार्की में होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम इन डिस्कशन इन डेप्थ करेंगे ड्यूरिंग द थ्रू आउट द सेशन। ठीक है, जब बात करते हैं, जब हम ये सारी चीजें समझ लेंगे तो फिर हमारे एडवांस होते जाएगा टॉपिक, जैसे एप्लीकेशन आईडी क्या होती है, कैसे हम एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ग्रुप को हम फिल्टर करते हैं, किस तरीके से फेसबुक बेस हम कोई भी चीजों को अलाउ कर सकते हैं, यूट्यूब बेस किस चीज को अलाउ कर सकते हैं। आपने कंपनी में देखा होगा कि आपके कंपनी में जब कोई वेबसाइट खोलते हो तो कई बार आपको लिखा आता है कि दिस वेबसाइट कैन नॉट बी, लाइक दिस वेबसाइट इज ब्लॉक, यू कैन नॉट ओपन, लाइक इस तरह से कुछ मैसेज आता है आपको, ब्लॉक पेज रिस्पॉन्स आता है। तो वो सब कैसे होता है, किस तरीके से एप्लीकेशन को, फेसबुक को, यूट्यूब को, जीमेल को अपने ऑफिस में ब्लॉक कर सकता हूँ और यूजर को बिल्कुल ही उसको एक्सेस ना मिले, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे, उसको हैंड्स ऑन हम समझेंगे पूरा। एक एक चीज में आप लोग को पैकेट फिल्टर में जो पैकेट फ्लो हमारा है, इसके अंदर हर एक चीज को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से मेरा पैकेट फॉलो ऑल्टो फायरवॉल में आता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में स्लो पाथ क्या होता है, फास्ट पाथ क्या होता है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कंटेंट इंस्पेक्शन कैसे चलता है, फिर फाइनली हमारा इग्रेस इंटरफेस से कैसे मेरा ट्रैफिक बाहर जाता है फॉलो ऑल्टो फायरवॉल के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली, मैं बार बार इसलिए प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ऑल थियोरेटिकली, कॉन्सेप्ट हम समझेंगे समझेंगे लेकिन सारी चीजें इन लैब, बिकॉज लैब इज लाइक मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है, फिर हमारी बात आती है कंटेंट, जो डेटा आप किसी भी यूजर के मशीन से कहीं पे एक्सचेंज करते हो, अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से, आप इंटरनेट पे कोई भी चैट करते हो, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो, फायरवॉल इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड योर ऑल कम्युनिकेशन, कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, किस तरह का कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई डेटा लीक तो नहीं कर रहे हो आप, कोई डॉस प्रोटेक्शन तो नहीं हो रहा है उसके अंदर, कोई यूआरएल ऐसी तो एक्सेस नहीं करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी कंपनी में अलाउ ही नहीं हो। तो वो सारे डेटा को भी फॉलो टू फायरवॉल इंस्पेक्ट करती है और उसके बेसिस पे वो एक्शन लेती है। राइट, सो ये भी हम टेस्ट करेंगे अपने लैब में, एक एक चीज टेस्ट करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम थियोरेटिकल पढ़ेंगे, सारी चीज टेस्ट करेंगे। ठीक है, और वो भी लाइव कैलिनिक्स मशीन के साथ। हमारे पास एक मशीन है कैलिनिक्स मशीन, अगर लैब में आप देखोगे तो मैं जनरली यूज करता हूँ, देखो दिखाता हूँ किस तरीके से। तो ये कैलिनिक्स मशीन है, इससे लाइव हम डॉस अटैक करते हैं, इससे लाइव हम वल्नरेबिलिटी अटैक करते हैं और इसको हम फायरवॉल पे प्रोटेक्ट करते हैं। वो सारी चीज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो रमी कौन सी लैब हमने खोल रखा था, हमने एक्टिव एक्टिव लैब खोल रखा था, मैं इसको खोल लेता हूँ फॉर टाइम बिंग, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिलती है आप लोगों को। फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हम सिक्योरिटी एंड फाइल ब्लॉकिंग, कोई पीडीएफ फाइल ब्लॉक करना है, कोई किसी तरह के एक्सेल फाइल ब्लॉक करना है, कोई अदर टाइप की फाइल ब्लॉक करना, वो सब भी कैसे हम ब्लॉक करते हैं वो सब भी हम सीखेंगे। वाइल्ड फायर, ये जीरो डे अटैक के लिए होता है, बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है वाइल्ड फायर के बारे में, सैंड बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे पूरी लाइव ट्रेनिंग में, हम इसको टेस्ट भी करेंगे। राइट, फिर हमारा एसएसएल डिक्रिप्शन आता है, किस तरीके से हम कोई इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके उस पर हम पॉलिसी को इन्फोर्स करते हैं, कैसे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है, कैसे आउटबाउंड डिक्रिप्शन काम करता है, कैसे इनबाउंड डिक्रिप्शन काम करता है, ये सारी चीजें भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। राइट, फिर हमारी यूजर आईडी आती है, दैट्स एडी इंटीग्रेशन विद द पालो अल्टो फायरवॉल कैसे होगा, वो मैं करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि एडी कैसे इंटीग्रेट होता है और कैसे हम एडी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर को हम अलाउ कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन इट एंड विद द लैब टेस्टिंग। फिर हमारे पास बात आती है साइड टू साइड वीपीएन्स, राइट, आईपी से एक्सटर्नल ग्लोबल प्रोटेक्ट, स्टिल आप लोग को सारी लैब्स मिलेगी साइड टू साइड वीपीएन की जितनी है, और विद द ग्लोबल प्रोटेक्ट कैसे बिल्कुल लैब में टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा कि ग्लोबल प्रोटेक्ट कैसे चलता है। राइट, सारी लैब्स हमारे पास हैं, हमें सब कुछ, क्लाइंट ग्लोबल प्रोटेक्ट्स कैसे कनेक्ट करता है, कैसे इंटरनल सर्वर को एक्सेस करता है,
कैसे हमारी साइड टू साइड वीपीएन चलती है, राइट। मैं आप लोग की तो ये सब लैब हमने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है। आप लोग को अगर लगता है कि नहीं इन लैब से मेरा काम नहीं हो रहा, तो यू कैन ऑल्सो डिजाइन योर लैब्स। आप टोपोलॉजी बना सकते हो, आप लोग को फुल एक्सेस होगा एंड यू कैन डिजाइन योर लैब्स। जो भी आपको पसंद है वो लैब आप डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैब्स हैं और उस पर हम टेस्टिंग करेंगे अपने थ्रू आउट सिस्टम में। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइड टू साइड वीपीएन में 2 चैप्टर्स जो हर जगह यूज होता है, पालो अल्टो इंजीनियर या किसी भी फायरवॉल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट वीपीएन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। फिर आपका आता है डैशबोर्ड, बेसिक लॉगिंग, रिपोर्टिंग, पैनोरामा। पैनोरामा क्या होता है, कैसे इसको पैनोरामा को हम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे प्री टूल पोस्ट टूल को हम वेरीफाई करेंगे, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरा जितना मैक्सिमम हो सके उसको हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम फाइनली लैंड करेंगे एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होता है, एक्टिव एक्टिव होता है, एचए कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। सो कोर्स मॉड्यूल इज अ वेरी वाइडर, राइट। सो इसको हमें कवर करने के लिए ऑलमोस्ट अगर हम वीक में 5 डेज क्लास करते हैं तो भी हमारा ऑलमोस्ट 2 मंथ का कोर्स है, 1.5 महीने या 1.5 से 2 महीने का कोर्स हमारा लगेगा ये। तो जनरली हम 4 दिन क्लास करते हैं वीक में या फिर 5 दिन करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 4 डेज क्लास करना जो हमारा रेगुलर होता है। तो एक दिन का आप लोगों को थोड़ा सा 3 दिन का गैप में तो प्रैक्टिकल लैब कर सकते हो, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा लोड भी ना हो। तो वी विल ट्राई टू डू कि हम 7 से स्टार्ट करें और 8:30 में इसको खत्म कर दें। और फिर हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ठीक है। सो आई होप कि जो नए होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या कोर्स कंटेंट हम कवर करने वाले हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल आज पहली बार लाइव ज्वाइन किए हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, सो प्रीवियस क्लास के यूट्यूब वीडियो अगर देखोगे तो मैंने पूरी फायरवॉल के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया है, पालो अल्टो फायरवॉल की हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है, पालो अल्टो फायरवॉल क्यों मैं यूज करूँ इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी को डाउट हो तो फिर मेरे से अपकमिंग क्लास में पूछना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पालो अल्टो के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था पिछले हम सेशंस में। आज हम एक्चुअल बात कर रहे हैं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो द पीपल इज गोइंग टू आस्क अबाउट द स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं, यही हमारा कोर टॉपिक है। क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं इनिशियली, हम बहुत स्लोली जाते हैं ताकि हमारा जो भी मतलब माइंडसेट हो बहुत स्ट्रांग रहे और हमें छोटी छोटी चीजों की अच्छी समझ रहे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस, तो किसी को अगर आइडिया है तो मुझे आप एक्सप्लेन करो। देखो स्लाइड में तो लिखा हुआ जो लिखा ही हुआ, अगर कोई अपने साइड से एक्सप्लेन करना चाहता है, किसी को आइडिया, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल फायरवॉल, तो कोई डिफाइन करना चाहेगा, कोई वॉलंटियर लेना चाहेगा, एनीवन कि जिसको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है लेमन लैंग्वेज में, कि स्टेटफुल का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस फायरवॉल का मतलब क्या होता है। कोई भी एनीवन टेक अ वॉलंटियर। अगर किसी को लगता है, आप लोग गलत सही कुछ भी आंसर दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मतलब सही हो या कुछ मैं जज करने वाला हूँ। बस मुझे कॉन्सेप्ट में समझना चाह रहा था कि अगर किसी को लगता है कि नहीं आई वांट टू कंट्रीब्यूट, आई वांट टू टेल समथिंग, तो आप लोग बता सकते हो। एनीवन? नो? डरो नहीं दोस्तों, इतना तो मैं कंफर्टेबल हूँ आप लोग के साथ। नॉट आइडिया हेलो सर। सर। हेलो, हाँ हेलो सर। बताइए। हाँ सर, ये स्टेटलेस फायरवॉल जो है लेगेसी हम्म, फायरवॉल है। स्टेटफुल अच्छा। फायरवॉल जो है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेडिशनल फायरवॉल है सर। और इसके अंदर स्टेटलेस फायरवॉल में लेयर 2, लेयर 3 और लेयर हम्म 4 तक ही कर सकते, यूज कर सकते। बट ये स्टेटफुल फायरवॉल में लेयर 7 भी कर सकते, मतलब एप्लीकेशन अवे कुछ एप्लीकेशन भी डिनाई और परमिट कर सकते हैं। वेरी गुड डलीम, वेरी गुड। मतलब काफी अच्छा, आपने बहुत प्रिसाइसली बहुत आंसर दिया। कोई और मतलब वॉलंटियर करना चाहता है, किसी को और अंडरस्टैंडिंग? बहुत अच्छा अलीम, थैंक यू सो मच अगेन। हाय this is हाय हाय देवाशीष जी, कैसे हैं? आपको तो आइडिया होगा आई थिंक। हाँ स्टेटफुल फायरवॉल है जो यूजर सेशन जो उनका एक सेशन टेबल मेंटेन करता है।
जो स्टेट टेबल होता है, तो जो यूजर का ट्रैफिक रहता है, बट स्टेटलेस में द फायरवॉल डजंट, मतलब उसका सेशन टेबल मेंटेन नहीं करता। सो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जितना भी है वो स्टेटफुल है, बट लेगेसी जो फायरवॉल है ऑल आर स्टेटलेस। वेरी गुड, वेरी गुड। कंप्लीटली 100% करेक्ट। बोथ आप अलीम बिल्कुल बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात की हो। और यही होता है जब भी आप लोग मतलब इंटरव्यू देना चाहो तो ऐसे ही आंसर देना है, क्योंकि उसके अलावा कुछ बचता है नहीं। जब इतनी सारी चीजें बताते हो, जैसे अलीम ने हाफ चीजें कवर किया, हाफ चीजें देवाशीष ने कवर किया, तो दोनों को अगर मिलाता हूँ दैट इज गोइंग टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, मतलब दे वांट टू कंट्रीब्यूट, कुछ और पॉइंट किसी के पास हो, कोई भी अगर गलत सही कुछ भी अगर दिमाग में चल रही है तो यू गाइज कैन टेल मी। कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे अलीम ने और देवाशीष जी ने जैसे बताया मुझे स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का डेफिनेशन, कुछ मैं पैकेट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मान के चलिए कि किसी कलर का मैं पैकेट जैसे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये अलग से दिखे। तो कोई भी पैकेट होता है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे अलीम जी ने बताया कि कोई भी पैकेट होता है तो उस पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप लोग पहले ये पता होना चाहिए कि पैकेट जो मेरा होता है, कोई भी आईपी पैकेट होता है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। उसके अंदर आपके पास सोर्स मैक होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक होता है। कोई भी पैकेट के अंदर सोर्स आईपी होती है, डेस्टिनेशन आईपी होती है, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन होता है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन आपका हो गया लेयर 2 हो गया, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो गया आपका लेयर 3 हो गया, ये दोनों ही लेयर 2 हो गया। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन हो गया लेयर 4 हो गया, और ये वाला इन्फॉर्मेशन आपका लेयर 7 हो गया। तो ये सारे एक आईपी पैकेट, जो भी कोई भी आईपी पैकेट आप उठाओगे ना, IPv4 का जो भी पैकेट होता है उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। IPv6 में इसी तरीके से होता है, हेडर उसका भी होता है, लेकिन उसका हेडर थोड़ा बड़ा होता है, बट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हैव अ सिमिलर। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया। फिर इसके अंदर भी कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन भी होती है, एंड फाइनली आपके पास कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? एक्चुअल डेटा, एक्चुअल जो यूजर डेटा भेजना चाहता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा डेटा है, मैं हेलो बोल रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को हेलो जा रहा है, दिस इज द पेलोड, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, वो जा रहा है। तो आपका यहाँ पे लेयर 2 भी हो गया, लेयर 3 भी हो गया, लेयर 4 भी हो गया, लेयर 7 भी हो गया, और इसके अलावा भी इसमें कुछ यूजर आईडी होता है। ठीक है, इसके बाद इस पे एप्लीकेशन आईडी होता है। ये एप्लीकेशन आईडी तो चलो इसी में लेयर 7 में आ गया। इसमें इसमें मशीन आईडी भी कुछ होता है आपका। तो ये सारी बेसिस पे और भी एक दो चीजें ऑप्शनल होती हैं, यूआरएल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी और आ जाती हैं। तो ये जो पैकेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, राइट, एक जो पैकेट होता है ये सारी इंफॉर्मेशन जो कैरी करती हैं, जो इतना बड़ा पैकेट का इंफॉर्मेशन जो होता है, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन जो चेक होता है, वो हमेशा उस फायरवॉल में चेक होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपका लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 आप यूजर आईडी, मशीन आईडी, यूआरएल, कंटेंट सब कुछ चेक कर सकता है। लेकिन एक जो हमारी पुरानी फायरवॉल होती थी वो क्या करती थी कि वो सिर्फ आपके सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और उसका ऐप, बस यही दो दो इन्फॉर्मेशन ही इसमें एप्लीकेशन में नहीं चेक होता था। इसके बाद कंटेंट भी होता तो चेक नहीं होता था। तो मतलब आपके पास सिर्फ लेयर 3, लेयर 4 या मैक्सिमम आप लेयर 2 के बेसिस पे भी आप कुछ कुछ इसमें चीजें कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि आप आईपी और पोर्ट के बेसिस पे आप उसको खेल सकते थे पुरानी फायरवॉल के बेसिस पे। तो जितनी भी हमारी पुरानी फायरवॉल होती थी, जितनी भी लेगेसी फायरवॉल होती हैं, वो सारी हमारी फायरवॉल स्टेट लेस होती थी। स्टेट लेस का मतलब क्या होता है? स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? स्टेट लेस का मतलब कि उनके पास कोई स्टेट का मतलब कि मतलब कोई ऐसा स्टेट जिसको आप मेंटेन करते हो, कोई डेटा, कोई कैसे अपने ब्रेन में रखते हो, कोई डेटा आप रिपोजिटरी मेंटेन करते हो, राइट। तो स्टेटफुल का मतलब होता है कि आप कुछ मेंटेन कर रहे हो अपने ब्रेन में, या कहीं एक्सेल फाइल में, या कहीं अपने कैशे में, कहीं मेमोरी में।
स्टेटलेस का होता है कि आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कि मतलब जो आ रहा है आप बार बार आपने अपने मतलब चीजों को चेक करते हो, जो एक आपके पास एक फ्लो ऑफ प्रोसेस बना हुआ है उसको चेक करते हो, देन यू प्रोसेस द फाइल्स। तो आपके पास कोई कैसे नहीं है, आप जो भी ट्रैफिक आ रहा है, नया आ रहा है, पुराना आ रहा है, उसके लिए आप एक ही धर्रे पे काम कर रहे हो, यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ टेबल एंड ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई पुराना क्लाइंट आया तो उसका ऑलरेडी डेटा है कि चलो भाई ये मेरे पुराने कस्टमर हैं तो इनके लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, नया है तो उनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा आप कुछ नहीं करते हो, यू जस्ट गिव द सेम ट्रीटमेंट इन द स्टेटलेस। तो स्टेटलेस में क्या होता है कि आप कुछ भी डेटाबेस, कुछ भी कैसे आप मेंटेन नहीं करते हो, और वो फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ आपकी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 पे इंस्पेक्शन कर सकती हैं। लेकिन जब आप स्टेटफुल की बात करते हो, स्टेटफुल जो फायरवॉल होती हैं, राइट, सो ये स्टेटफुल फायरवॉल जो होती हैं ये आपके लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7, कंटेंट, एप्लीकेशन, बहुत सारी एडवांस फीचर पे बात करती, काम करती हैं, इसलिए इन फायरवॉल को हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल का जो फर्स्ट डेफिनेशन है कि किस तरीके से पैकेट प्रोसेसिंग किया जाता है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि होता क्या है कि जैसे अब मान के चलो कि ये यूजर है, ठीक है, अब ये हमारी कोई पुरानी फायरवॉल है, ठीक है, अब ये फायरवॉल को मैं बोलता हूँ कि ये स्टेटलेस फायरवॉल है और इसको इंटरनेट पे google.com को एक्सेस करना है, ठीक है। तो स्टेटलेस फायरवॉल क्या करती है कि बेस्ड ऑन द यूजर के जो मशीन की आईपी हुआ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ शॉर्ट में, कि जैसे यूजर का आईपी एड्रेस हो गया, मान के चलो 10.10.10.10, इसको ये सोर्स आईपी हो गया, ठीक है, इसको डेस्टिनेशन आईपी पे जाना है कहाँ पे, google.com को, उसका आईपी मान के चलो कि 13.10.10.10 है। अब इसका कोई सोर्स पोर्ट भी होगा, मान के चलो कि सोर्स पोर्ट रैंडम ले लिया 1 2 3 4, डेस्टिनेशन पोर्ट ये मान के चलो कि ये करना चाहता है HTTPS, HTTPS आपका 443 पे काम करता है, ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। तो इसके लिए ना आपको एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं ACL। इसके लिए आपको फायरवॉल में एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसी पॉलिसी को हम ACL बोलते हैं। बेसिकली ACL जो हमारी लेगेसी फायरवॉल होती थी, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, उसके अंदर हम एक लेगेसी मेथड के थ्रू हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे। उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि अगर ये यूजर आता है इस सोर्स के साथ, अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो मेरे पास ACL होना चाहिए, अगर वो मेरा ACL में एंट्री मैच करेगा तब तो ये अलाउ करेगा, वरना उसको यहीं पे ड्रॉप कर देगा। लेकिन सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन चेक करेगा, वो उसकी आईपी एड्रेस और वो पोर्ट नंबर्स, जो लेयर 3 एंड लेयर 4 इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसको चेक करेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू डिसाइडेड कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक कंडीशन ही हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा, मतलब ये यूजर पहली बार आया, ठीक है, तो भी ACL चेक किया, दूसरी बार आया तो भी ACL चेक किया, तीसरी बार आया तो भी ACL चेक किया, मतलब 1000 टाइम, 2000 टाइम, 5000 टाइम, जितनी बार ये गूगल पे जाएगा वो बार बार जाकर ACL को चेक करेगा, क्योंकि उसके पास कोई कैसे नहीं मेंटेन करता है, कोई डेटाबेस नहीं मेंटेन करता है कि चलो ये यूजर आ चुका है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्डिंग कर दूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो हर बार डेटाबेस को पूरा पढ़ेगा, पूरा उसको अंडरस्टैंड करेगा, देन इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस द पैकेट, हर बार एक ही ट्रीटमेंट करेगा। ये हमारा स्टेटलेस का नेचर ऑफ द पैकेट फ्लो होता है। लेकिन अगर सेम काम मैं अगर स्टेटफुल की बात करता हूँ, सेम काम अगर मैं स्टेटफुल की बात करता हूँ, तो स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है कि जब हम स्टेटफुल फायरवॉल की बात करते हैं तो इस फायरवॉल में क्या होता है कि सेम चीज जो ACL होता है ना, वैसा ही यहाँ पे हम ACL को बोलते हैं पॉलिसी, इसी का एडवांस वर्जन है, इसको बोलते हैं पॉलिसी। अब इसमें ACL में क्या हो रहा था कि सिर्फ आप दो ही पैकेट चेक कर रहे थे, आप या तो L3 चेक कर रहे थे या तो L4 चेक कर रहे थे। लेकिन अगर पॉलिसी में बात करो तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, आपका इसमें L3 भी चेक होता है, आपका इसमें L4 भी चेक होता है, आपका इसमें L7 भी चेक होता है, आपका इसमें कंटेंट भी चेक होता है, आप इसमें यूजर आईडी भी चेक होता है, ठीक है, आप इसमें URL भी चेक कर सकते हो, आप इसमें मशीन आईडी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो इसमें नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक ग्रैनुलर होता है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बड़ा होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूजर है, इसको google.com पे जाना है, तो
google.com पे जाएगा तो पहला पैकेट जब आएगा, जब भी, तो वो क्या करेगा, ये जो पॉलिसी बना हुआ ना यहाँ बनाया है, जिसको ACL में बोल रहा हूँ, इसको जाके चेक करेगा कि बॉस ये यूजर जो है google.com पे जाना चाह रहा है 443 पोर्ट पे, क्या इसके लिए पॉलिसी अलाउ है। तो अगर इसके स्टेट टेबल में वो, स्टेट टेबल नहीं सॉरी, इसके पॉलिसी इंजन में अगर वो पॉलिसी अलाउ होगा तो बोलेगा हाँ ये अलाउ है, तो इसको ये यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि ये पर्टिकुलर यूजर के लिए इंटरनेट पर जाने के लिए पॉलिसी अलाउ है, तो ये क्या करेगा, अपने ब्रेन में एक कैसे एक स्टेट क्रिएट कर लेगा, एक स्टेट टेबल कि ये यूजर है, इसके लिए इस पोर्ट से इस पोर्ट पे कम्युनिकेशन कराना है, इस आईपी से इस आईपी पे कम्युनिकेशन कराना है, तो वो एंट्री अपने कैसे टेबल में रख लेगा, जो मैं आपको आगे क्लासेस में दिखाऊंगा कैसे स्टेट टेबल दिखती हैं। तो वो कैसे टेबल में रख देगा। तो अब अगली बार जब यूजर आएगा ना, तो वो जाके पॉलिसी नहीं चेक करेगा, वो सीधे स्टेट टेबल जो कैसे टेबल यहाँ बना हुआ है ना उसको चेक करेगा और फिर वहां से ये चला जाएगा इंटरनेट पे। तो ये दोनों में एक फर्क होता है। स्टेटलेस में क्या होता है कि वो बार बार ACL को चेक करेगा जो पॉलिसी बना हुआ है, और इसमें पहला पैकेट सिर्फ चेक होता है, दूसरा पैकेट जब आएगा, जब भी आएगा तो वो स्टेट टेबल से होते हुए बाहर जाएगा, स्टेट टेबल से होते हुए बाहर जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो कम्युनिकेशन है आपका एक यूजर से एक डेस्टिनेशन के बीच में इस तरीके से आपका चलता है। तो ये आपका स्टेटफुल, और इसमें आपकी जो चेक्स होती है बहुत ज्यादा होती है, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, एक एक फीचर चेक करके दिखाऊंगा इन अपकमिंग सेशन कि आपकी चीजें कैसे 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 चेक होती हैं इन स्टेटफुल फायरवॉल, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो, राइट, सो इन स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल, राइट, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमारा क्या है कि जब भी हम इसको बात करते हैं, एक सेकंड में दीजिएगा। हाँ, तो जब भी हम बात करते हैं इसके लिए कि हमारा स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें डेफिनेशन क्या बोलता है, इन स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल वर्क बाय treating each packet as an isolated unit। तो मैं वही बता रहा था कि हर एक पैकेट को एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह ट्रीट करता है, तभी वो बार बार जाकर स्टेटलेस में हमेशा वो ACL चेक करेगा, देन प्रोसेस जाएगा, हमेशा पैकेट आएगा ACL चेक करेगा, देन इट गो टू द इंटरनेट। लेकिन जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होता है उसमें क्या होता है कि दे वर्क just to maintain the context about the active session and use the state information to speed the packet processing। तो उसमें क्या होता है कि आपको बार बार जाकर ना, जब कोई पॉलिसी इंजन है उसको चेक नहीं करना, उसको आप परेशान नहीं करना। एक बार आपने चेक कर लिया, ठीक है, आपको पता चल गया कि इस यूजर के लिए इंटरनेट एक्सेस अलाउ है, आप उसका स्टेट टेबल एक कैसे टेबल मेंटेन कर लो, और बेसिकली आप बार बार उसको यहाँ से प्रोसेस करते रहो, बार बार आप यहाँ से इसको प्रोसेस करते रहो, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, और इसमें आपकी एक स्टेट टेबल हमेशा मेंटेन होकर रखती है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए। डिफॉल्ट टाइमर्स होता है, एक बार डेटा सेट देखना पड़ेगा, आई थिंक हर एक एक्टिव सेशन के लिए 30 मिनट रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है कि जो मेंटेन रहता है, फिर अपने आप वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो विल सी एग्जैक्ट टाइमर्स इन ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप नीचे पढ़ते हो, सो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रीट ईच पैकेट इज एन आइसोलेटेड इन द डज नॉट रिलेट टू कनेक्शन स्टेट। इसमें आपको हर एक को पैकेट के लिए एक बार चेक करता है। फर्स्ट पैकेट इज गोइंग टू बी चेक बाय द पॉलिसी और ACLs। बाकी जो सेकेंड पैकेट जब भी आएगा दे आर गोइंग टू मेंटेन द स्टेट्स, राइट। सो उससे आपका पैकेट प्रोसेसिंग आपकी फास्ट हो जाती है। ये बेस्ड ऑन द फ्लो पे चलता है, ये बेस्ड ऑन द पैकेट हेडर्स, जो भी पैकेट आता है उसके अंदर हेडर होती है, जो IP पोर्ट डिटेल होता है उसके बेसिस पे चलता है। और ये फ्लो अगर मैच किया, आपका वो फ्लो का स्टेट है आपके पास, वो फ्लो पूरा मैच किया है, देन इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस। इस तरीके से वो चलता है। इसमें मेमोरी और CPU यूटिलाइजेशन आपकी लो होती है, इसमें हाई होती है, क्योंकि इसमें एक स्टेट मेंटेन करके रखना है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है इसमें। तो बट नेचुरल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जितनी भी आती हैं उसमें उनकी बैकप्लेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी CPU यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हाई पावर के लगे हुए आते हैं, इसलिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इसमें सिक्योरिटी लो होती है, इसमें सिक्योरिटी हाई होती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है चेक करने के लिए, ठीक है। कनेक्शन स्टेटस में अननोन होता है, इसमें नोन होता है। परफॉर्मेंस इसका थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी आपकी कम है चेक करने के लिए, इसमें ज़्यादा स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटलेस वर्सेज स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर आपकी चीज़ें आती हैं।
ठीक है, तो ये जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो आई मस्ट से कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज अ स्टेटलेस फायरवॉल एंड व्हाट इज अ स्टेटफुल फायरवॉल। तो आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी तो फायरवॉल कोई भी पढ़ो, पालो अल्टो पढ़ो, फोर्टिनेट पढ़ो, सपोज पढ़ो, एएसए पढ़ो, आप अ, और भी फोर्टिनेट पढ़ो, लेकिन आपको ये सारी चीजें जो हैं बहुत बेसिक हैं और फायरवॉल में पूछी जाती हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो बताओ आप लोग मुझे, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा तो मुझे बताओ आप लोग। सो मुझे पता है कि आज आईपीएल है, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं एज शुरू हो पर। गया। हाँ, तो आप लोग को मैं जस्ट रिलीव कर देता हूँ, ठीक है? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना यू गाइज कैन एंजॉय, ठीक है? और फिर हम कनेक्ट करेंगे, और जब अगला हम सेशन अरेंज करेंगे तो इट इज गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द प्रॉक्सी एंड द फायरवॉल्स। इसके बारे में भी हम एक छोटा डिस्कशन करेंगे कि कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कई बार इंटरव्यू में क्या होता है कि पूछते हैं लोग कि व्हाट इज अ प्रॉक्सी, व्हाट इज अ फायरवॉल, हम दोनों यूज करें, एक यूज करें। तो बहुत दिमाग में ना लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्लियरिटी नहीं होता है। तो आई विल मेक इट वेरी क्लियर टू एवरीवन कि प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है और किस सिनेरियो में प्रॉक्सी यूज करना चाहिए, किस सिनेरियो में पालो अल्टो या कोई भी फायरवॉल यूज करना चाहिए, नॉट पालो अल्टो। तो इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्या यूज केस हो सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा। इसके बाद व्हाट विल डू कि हमारा बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर ली। देन विल स्टार्ट द एक्चुअल थिंग्स अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड द आर्किटेक्चर कि हमारा जो है। सो प्रोबेबली हम इसी वीक अपने सेशन को पूरा फुल फ्लैश में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कि जो भी हमारा डिस्कशन है कैसे कैसे हमारा जाने वाला है, राइट? हेलो। हाय हाय सुनील, यस। हेलो, मैं दिनेश बात कर रहा हाय दिनेश, बताइए बताइए दिनेश। हूँ। सर ये बोल रहे थे, जैसे मैं डेस्कटॉप सपोर्ट में भी काम कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मेरा सेशन ऑलरेडी हुआ है। देखो, साइबर सिक्योरिटी, देखो मैं आपको थोड़ा सा, आपने पूछा है तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि देखो हमारे पास सिक्योरिटी के ना तीन टोटल प्लेटफॉर्म है। एक क्लाउड सिक्योरिटी है, ठीक है? एक हमारे पास दूसरा है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। तीसरा है जो नेटवर्क सिक्योरिटी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कई लोगों को डाइजेस्ट हो या कई लोगों का ना हो, लेकिन बड़ा फ्रैंक बात करता हूँ क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और मैं ना बड़ा बेसिक पे फोकस करता हूँ। कोई मेरे से पूछता है कि मेरे को ना सीसीआई करना है, ठीक है, या मेरे को सीसीएनपी करना है, मैं क्या करूं? राइट? वो सीसीएनपी हो सकता है कि वो डेटा सेंटर में करना चाह रहा हो सकता है वो सर्विस प्रोवाइडर में करना चाह रहा हो, या हो सकता है कोलैबोरेशन में करना चाह रहे हो, कहीं भी वो करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। सीसीआई के केस में भी ऐसा ही होगा, सीसीआई डीसी कर सकते हो, सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट? सीसीआई आप इसमें सिक्योरिटी कर सकते हो, कुछ भी इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें भी कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप बिगनर हो, अगर आपको कोई बोले कि आपको सीसीआई करना है, ट्रस्ट में, या सीसीएनपी करना है, मेरा सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है कि जब तक आपको नेटवर्क फंडामेंटल नहीं पता है, बेसिक नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है? ओके। तो ये बेसिक नेटवर्किंग नहीं पता है तो आप ना कुछ भी करो, आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। आपको बेसिक नेटवर्किंग पता होना ही चाहिए, बेसिक नेटवर्किंग पता होना ही चाहिए। बेसिक नेटवर्क जैसे आपने बोला कि मैंने सीसीएनए कर रखा है, तो दैट्स गुड। तो एटलीस्ट आपको ये पता है, सीसीएनए आपने कर रखा है तो आपको ये पता है कि विलेंस क्या होता है, ठीक है? आपको ये यस। पता है कि आईपी क्या होती हैं, आपको ये पता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राइट्स? आपको ये पता है कि बेसिक जो हमारा स्विचिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटर स्विच कैसे काम करते हैं, उतनी चीज पता है। क्योंकि इसमें से कोई ऐसा ट्रैक नहीं है ना जहाँ पे आपको इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। आप सिक्योरिटी में पढ़ा रहा हूँ पालो अल्टो, इसमें मैं बीजीपी, कल का सेशन देखोगे आप लोग तो बीजीपी ओएसपी सब हमने पढ़ाया है इसके अंदर। इसके अंदर राउटिंग है, आपको स्टैटिक राउटिंग भी करनी पड़ती है। इसके अंदर विलेंस भी समझना आपको, लेयर 2 जब कम्युनिकेशन तो विलेन भी बताऊंगा मैं आपको, इंटर विलेन राउटिंग भी सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि फायरवॉल है तो मैं नहीं सिखाऊंगा, इसके अंदर है भाई, जो फीचर तो सीखना पड़ेगा ना आपको।
तो आजकल के जो हमारी डिवाइसेस आ रही हैं तो उसके अंदर सब कुछ है। तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, आपको बेसिक नेटवर्किंग पता नहीं है तो आपको हमेशा स्ट्रगल होगा कि बाकी चीजें सीखने में। तो आपको हमेशा कभी न कभी आपको पूरा आपको वीलैंस आईपी सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड सिक्योरिटी की जब बात करते हो किसी भी ट्रैक पे, चाहे क्लाउड सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी हो, कई लोग बोलते हैं कि जी मैं क्लाउड सिक्योरिटी कर लेता हूँ, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्लाउड सिक्योरिटी करने जाओगे तो ये नहीं बताया जाएगा कि पॉलिसी एसीएल से कैसे काम चलता है, उसमें आपका यूआरएल फिल्टरिंग कैसे होती है, उसमें आपका क्या बोलते हैं कि आपका एप्लीकेशन बेस आप कैसे पॉलिसी को अलाउ करते हैं, कैसे डिजाइन, उसमें भी आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। डिफरेंस है कि वो क्लाउड में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी में आप करते हो वहाँ पे आपको करने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, कुछ कुछ एक आध दो चीजें हो जाए। पॉलो अल्टो यूज करोगे तो ट्रस्ट में, अगर पॉलो अल्टो फायरवॉल अगर क्लाउड में डिप्लॉयड है तो आपको सेम ही सारा फीचर मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा। सिर्फ प्रिज्मा का सैसी सॉल्यूशन को छोड़कर, जो सैसी बेस है तो उसका थोड़ा डिप्लॉयमेंट चेंज हो जाता है। बाकी अगर किसी ने वीएम इमेज लेके क्लाउड में डिप्लॉय कर रखा है पॉलो अल्टो को तो एग्जैक्टली सेम ही फीचर मिलेगा, वहां पे कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला है। अब रही बात साइबर सिक्योरिटी के, अब देखो साइबर सिक्योरिटी का जो थोड़ा सा ट्रैक है ना वो क्लाउड सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी से अलग है, क्योंकि इसमें आपको कुछ टूल सीखने पड़ते हैं, कुछ इसमें आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, कुछ आपके इसमें हैकिंग के कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ते हैं। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप बेसिक नेटवर्किंग के बिना आप काम, जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हैं पढ़ते हैं जहां तक मतलब जो इसका कोर्स कंटेंट है, जो भी इसमें भी आपको बेसिक नेटवर्क फंडामेंटल सिखाया जाता है, इसमें भी आपको सिक्योरिटी सिखाई जाती है। फिर जाके आपको टूल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग कराया जाता है कि भाई कैसे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। तो मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है, अगर मेरे साथ प्रश्न में पूछो तो मैं अगर किसी भी बंदे को अगर बोलूं कि किसी भी फील्ड में जाना है तो उसको सीसीएनए आना चाहिए, प्लस कोई एक फायरवॉल आना चाहिए बेसिक, कोई भी एक फायरवॉल आना चाहिए, किसी भी फायरवॉल को आप कर लो आपको आना चाहिए। वो फायरवॉल आपका सिस्को का एएसए हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता वो आपका चेक पॉइंट हो सकता है, वो आपका पोलो अल्टो हो सकता है, या आपका फोर्टीगेट या फोर्टीनेट जो भी है वो होता है हो सकता है। तो ये इसमें आपका कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब यू आर गुड फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो मेरा कहना है कि अगर दिनेश आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को फायरवॉल आती है, सीसीएनए आता है, यू कैन गो डायरेक्टली, आप वहां पे सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे लैक कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप फायरवॉल या सीसीएनए जरूर करो, क्योंकि ये बेस फाउंडेशंस हैं, इसके बिना आपको बहुत परेशानी होगी। ट्रस्ट में आगे चल के आपको कभी न कभी सीखना ही पड़ेगा। आप अगर कहीं से क्लासेस नहीं लेते हो तो सेल्फ स्टडी करके आपको सीखना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को। सो दिस इज माय जस्ट सर सजेशन फॉर योर। सर हाँ जी बताइए। मैं अगर सेशन ने किया उसके बाद एक फायरवॉल कर लिया तो फायरवॉल तो यानी कोई भी कर सकता हूँ उसमें से? आप कोई भी कर लो फायरवॉल, आप डिपेंड करता है कि आप मतलब कि जैसे सिस्को ऐसे करते हो राइट, तो उसकी स्कोप्स जो है फायरवॉल की मार्केट में बहुत कम है राइट। सिस्को आप किसका? चेक पॉइंट सिस्को ऐसे जैसे कर लेते हो फायरवॉल आप, तो उसके स्कोप जो बहुत कम है मार्केट में। पोलो अल्टो इज मोर फेमिलर, मतलब पॉपुलर, आपका चेक पॉइंट बहुत पॉपुलर है, चेक पॉइंट से ज्यादा फोर्टिनेट पॉपुलर है। तो चेक पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा कर लो, या फोर्टिनेट कर लो, या पोलो अल्टो कर लो, तीनों में से कोई एक फायरवॉल कर लो, अच्छे से कर लो, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक आपको यूआरएल फिल्टरिंग आना चाहिए, कंटेंट आईडी कैसे होता है, कैसे बनता है, आपकी जो एडवांस एंटीवायरस मालवेयर प्रोटेक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको अगर पता है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नेट कैसे बनते हैं, तो आपके लिए फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे की लाइफ से। मेरा ओके। आपको सजेशन रहेगा, ठीक है। और इसके आगे सर सीएच, इसके फायरवॉल के बाद सीएच वर्जन 2.12 जो होता है उसको जो करना सीएच पड़ेगा? का आप कोर्स बात कर रहे हो ना, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, उसी में आपको पढ़ाया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स होगा उसमें सीएच भी, हैकिंग, एथिकल हैकिंग भी कराते हैं। हाँ, तो ठीक आप है। ये सर कराते हैं, आप ये कराते हैं? हमारे पास ट्रेनर हैं, मतलब मैं नहीं कराता हूँ सीएच एथिकल हैकिंग वाला, बट हमारे पास ट्रेनर हैं सीज लेडी, सो वो कराती हैं, तो मतलब हम बैच बना लेंगे उसके लिए और हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एथिकल हैकिंग पहले किया फायरवॉल से तो कोई प्रॉब्लम? मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आप जो साइबर सिक्योरिटी, जो ये सारी एथिकल हैकिंग वगैरह सब साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी करने से पहले आपने बेसिक नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, मेरा ये बस रिकमेंडेशन आपको। अगर आप ओके। करोगे जाकर तो आपको परेशानी होगी सीखने में, आपको वही चीज सिखाई जाएंगी
जो आपको बेसिकली इसमें बेसिक नेटवर्किंग, अगर आप यहाँ से सीख के जाते हो CCNA और बाकी चीजें, तो आपको बहुत लाइफ इजी होगा, आप तुरंत ग्रैब्स कर लोगे जो वहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है दिनेश? पंकज हाँ जी, सर। हाँ जी हरदीप जी बताइए। हाँ, दिस इज हर्षदीप। तो दिनेश जी के क्वेश्चन पे ना, लाइक ये आई मीन सिर्फ दिनेश नहीं, सबको थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का जो इनका क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा इनपुट देना चाहता हूँ, इफ यू हाँ अलाउ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल अलाउ हैं, दीजिए सर, आप बिल्कुल। जी। तो दिनेश, लाइक जैसे मैं कहूँ आईटी, तो आपके मन में क्या क्या आएगा अगर मैं कहूँ आईटी? आईटी में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? हेलो दिनेश, हाँ जी, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं कहूँ आईटी, तो आईटी में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? आईटी में सब कुछ आता है, नेटवर्क से लेके सर्वर से लेके उसका सिक्योरिटी तक सब कुछ। हाँ जी। तो पूरी आईटी आप पढ़ सकते हो? नहीं, ये तो मुश्किल है। एग्जैक्टली अब जब हम बात करते हैं साइबर की, तो उसको उसको पूरा एक आईटी ही मानो। साइबर मतलब आईटी। जैसे आईटी के नीचे आपके पास नेटवर्क अलग हो गया, डाटा अलग हो गया, सॉफ्टवेयर अलग हो गया, राइट? तो राइट। वैसे ही साइबर के नीचे आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी अलग हो गई, डाटा सिक्योरिटी अलग हो गई, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अलग हो गई। तो ऐसे आप साइबर को खोल सकते हैं, राइट? अब पूरे साइबर को आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप मैनेजमेंट प्रोसेस में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑपरेशन लेवल की बात करो कि आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन भी सीखनी है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी भी सीखनी है, आपको सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी सीखनी है, तो दैट वुड बी अ टफ जॉब, है ना? तो आपको सबसे पहले तो आईटी में आपका इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है? फॉर एग्जांपल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप नेटवर्क की सिक्योरिटी, जो कि साइबर सिक्योरिटी के नीचे एक पार्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अब नेटवर्क ठीक है। सिक्योरिटी को जब आप एक साइबर सिक्योरिटी पूरी को नहीं आप पकड़ सकते, जैसे मैंने आपको कहा आईटी, है ना? तो पूरी साइबर सिक्योरिटी को नहीं पकड़ सकते, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के नीचे जब आपने नेटवर्क सिक्योरिटी को पकड़ा, तब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उस नेटवर्क के ऊपर डाटा आता कहाँ से है, जाता कहाँ पे है। पैकेट फ्लो, डाटा फ्लो। पहले आप उस पैकेट फ्लो को पकड़ोगे, फिर आप समझोगे इसको रोकना कहाँ पे है, इसको फिल्टर जो लगाना है, मुझे क्या ब्लॉक करना है, क्या अलाउ करना है, ठीक है, उसका नफा नुकसान क्या होगा। तो वो सारी चीजें आप स्टेप वाइज करोगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज मत होइए कि ये बहुत ज्यादा है करने के लिए। आप पूरा पिज्जा एक बार में नहीं खा सकते, लेकिन पीसेस करके खा सकते हो। इसीलिए फिर साइबर सिक्योरिटी पूरी आप एक बार में नहीं समझ सकते, लेकिन जब उसे पीसेस करोगे देन इट वुड बी इजी। यस। ओके। सो दिनेश जी, जो हमारे हर्षदीप सर हैं, ही इज लाइक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो आई थिंक सीसी क्या कौन सा कोर्स कराते हैं सर आप, मतलब CCISP, राइट? मैं यहाँ पे बेसिकली एक स्टूडेंट बन के आया हूँ मैं। नहीं नहीं, तो जैसे बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए, लोगों को पता रहे ना, थोड़ा ठीक तो रहेगा। अपने बारे असल में में इतना अच्छा कनेक्ट करने ज्ञान में दे रहे हैं सुविधा तो। होती है सबको, नहीं तो जो है ना, हाँ, क्रेडिबिलिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है लोगों के दिमाग में। नहीं 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 नहीं, हरदीप सर मतलब ही इज वेरी नाइस एंड इसीलिए बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड नॉलेज है। थोड़ा सा हाँ अगर बता देते हैं तो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी हाँ एडवाइस को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया, आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया साइबर सिक्योरिटी को, मैं बहुत पसंद किया पर्सनली। सो 2 दिन पहले सर आप लोगों का वेबिनार था एक, मैं देखा था उसमें। हाँ तो उसमें आप लोग आपने बताया था सर कि मतलब एक फॉर्मल में मतलब कोई भी करके, और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही बताया था कि मतलब वो जो GCV ऐसे कुछ बताया था आपने। जी स्केलर। मतलब वो आगे इन सर मेरे फ्यूचर कुछ दो पर्सनल करना क्वेश्चन है। मुझे था। एक मिनट सुनील जी, एक मिनट, दिनेश जी का थोड़ा ले लेते हैं, फिर आपसे आपका भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत? हाँ बताइए दिनेश जी, क्या पूछ रहे हैं आप? यही जी मतलब स्केलर। इन फ्यूचर अगर मतलब घर से अगर काम करना पड़े अगर कंपनी के लिए, हम्म तो आगे अपोलो अल्टो जैसे, या अपोलो अल्टो या मैंने फोर्टिनेट किया, हम्म तो अगर घर से अगर कंपनी के लिए वर्क करना पड़े, घर से अगर काम करना इंसान चाहे हम्म एज वर्क इन द हाउस, घर से मतलब, तो आगे क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
कुछ नहीं, अभी भी पालो अल्टो फायरवॉल सीख के भी काम कर सकते हैं घर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पालो अल्टो में भी फीचर है, राइट। बट राइट। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है ना, वो थोड़ा चेंज हो रहा है दिनेश जी। उसमें क्या हो रहा है कि एक टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं सैसी, ठीक है। तो ये सैसी जो टर्म है, सिक्योर एक्सेस सर्विसेज, ये फ्यूचर है। तो इसके दो वेंडर्स हैं, जो सबसे तीन बेसिकली वेंडर हैं। एक आपका जी स्केलर है, ठीक है, एंड ओके। प्लस आपका नेट स्पोक है आपका, प्लस आपका एक आपका पोलो ऑल्टो है। तो इनका एक सॉल्यूशन है सैसी। इन तीनों बड़ी फेमस, इसको भी पाइपलाइन में है, और भी अलग अलग वर्षा है, अलग अलग वेंडर्स हैं पाइपलाइन में है, बट दे आर द मार्केट प्लेयर। तो जैसे आप अभी तक 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, जैसे फायरवॉल्स एक तरह से पूरे सिक्योरिटी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही थी। जैसे कि हम ऑफिस से काम करते थे, हमारे डेटा सेंटर से, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ द कनेक्शन से, जहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन जाते थे, तो हम इसको प्रोटेक्ट करते थे। बट हमारा अभी क्या हुआ कि पेंडेमिक के बाद वर्क कल्चर चेंज हो गया, बिल्कुल डाइवर्स हो गया। मोर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम द एनीवेयर, घर से काम कर रहा है, कोई ऑफिस से काम कर रहा है, कोई ट्रेवल करके काम कर रहा है, मतलब एनीवेयर। तो फिर इस केस में सिक्योरिटी को मतलब इन्फोर्स करना और कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से चलाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग विद द लेगेसी सॉल्यूशंस। जो भी हमारे पास लेगेसी अभी पॉलो अल्टो फायरवॉल जो पढ़ रहे हैं, या फोर्टिनेट फायरवॉल पढ़ रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए स्केलेबल नहीं है, मतलब कंपनियों के लिए स्केलेबल नहीं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन गार्डनर मैजिक ने डिजाइन किया, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैसी, इसको बोलते हैं सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। इस सैसी के अंदर ही हमारा, अगर आप बोलो कि नेक्स्ट 10 ईयर और 15 ईयर का क्या फ्यूचर है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगे। बट इसको सीखने के लिए भी आपको बेसिक सिक्योरिटी आना चाहिए। अगेन तो क्वेश्चन है कि आपको अगर बेस नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहीं से उठाकर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। सब कुछ जितना भी पॉलो ऑल्टो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है, सब कुछ यहीं पे अप्लाई किया गया है। बट थोड़ा तरीका चेंज कर दिया गया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जैसे पुरानी कार आती थी ना मारुति की 800, तो अभी जो नई यस। कारें आ रही हैं ऑटोमेटिक आ रही है, तो उसमें बहुत सारे फीचर आ गए हैं। तो अगर कोई पुरानी कार नई कार में कंपेयर करे, तो जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से, बट बेस इज, उसमें 4 टायर होने हैं, और उसमें स्टेयरिंग होनी है, एक हॉर्न होना, वो सब तो रहेगा ही रहेगा ना। उसमें कहाँ ले जाओगे, मैकेनिकल डिजाइन वगैरह सब तो ही रहेगा, बट हम बहुत सारी चीजें चेंज होंगी जो आपको एडवांस मिलेंगे। सही है, ठीक है दिनेश जी। ओके सर। हाँ जी सुनील जी बताइए, क्या पूछ रहे थे? पर्सनल क्वेश्चन बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पर्सनल हाँ सर, पूछिए, मैं ये पूछ प्रोफेशनल। रहा हूँ सर कि सर हाँ। मेरी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है टेलीकॉम हम्म सेक्टर का, जिसमें मैंने फील्ड में काफ़ी टाइम जॉब किया। राइट ना मैं एयरटेल में नोक इंजीनियर में हूँ। यहाँ मैं सर्वर और एप्लीकेशन देख रहा हूँ। हम्म तो मेरे लिए कहाँ तक बेहतर होगा सर, और आपका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने अच्छा। टाइम आप ट्रेनिंग दे देंगे, और हमारी जॉब प्रोफाइल। अभी तो मैं सर्वर देख रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं फायरवॉल अगर कर लेता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, और मेरी सैलरी वगैरह क्या होगी, मेरा काम क्या होगा, कुछ आइडिया देंगे सर हमें? हरदीप सर कुछ ज्ञान देना चाहेंगे इस पे? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी 7 से 8 साल एक्सपीरियंस है टेलीकॉम में, करीब 5 साल मैंने फील्ड में काम किया। टेलीकॉम में किस डोमेन में? मैंने सर नोकिया के साथ किया, जेटी के साथ, हुआवे के साथ किया। फील्ड में जितने भी अपने इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपका ठीक। फायरवॉल की जो डिवाइस है, ऐसे ही हमारे आपसे बात मेरी मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस लगी होती है टावर के नीचे और टावर के ठीक। ऊपर भी। तो उसको हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, तो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, दूसरे से भी कराया है। तो वहाँ मैं लीड था, तो मैं जेटी के साथ भी किया हूँ, जेटी इक्विपमेंट पे भी, नोकिया इक्विपमेंट पे भी, हुआवे पे भी, एरिक्सन के साथ भी किया है। और अभी मैं एयरटेल में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ मैं सर्वर देखता हूँ पैन इंडिया। ठीक है। तो ये है कि सर मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, मेरी क्या फ्यूचर होगी अगर मैं फायरवॉल करता हूँ तो, और कितने टाइम लगेंगे मुझे इसको सीखने में? फायरवॉल सबके लिए, चाहे वो सर्वर वाली टीम से है, ठीक है, आप टेक्निकल साइड की बात कर रहे हो, राइट? जी जी जी। टेक्निकल साइड की अगर मैं बात करूं, चाहे आप सर्वर वाली लाइन से आ जाओ, ठीक है, चाहे आप आ जाओ एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली साइड से, या फिर आप नेटवर्क वाली साइड से आ जाओ, फायरवॉल की जरूरत आपको पड़ेगी। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत आपको पड़ेगी, और आप इसको जितना जल्दी कर सकोगे उतना अच्छा है आपके लिए, जी। है ना? और सर्टिफिकेशन जो होते हैं ना, लाइक सिक्योरिटी के, आजकल के किसी भी डोमेन में आप आ जाओ, सिक्योरिटी इज मस्ट थिंग। सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन जब आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाती है, तो इट मेक्स वैल्यू, तो डेफिनेटली वो आपको वेल्थ वाइज भी हेल्प करेगी। बिल्कुल।
बहुत सही बोला। सो सुनील जी, मैं आपको थोड़ा सा जैसे सर ने बताया वैसे मैं थोड़ा सा ऐड करना था। जैसे जो मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सो मैं पहले एक टेलीकॉम इंजीनियर था, ठीक है। आई स्टार्टेड माय करियर एज टेलीकॉम इंजीनियर, और जिस फील्ड में आपने काम किया, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, मैंने पूरा जी हैंड्स जी ऑन काम किया हुआ, E1, T1, एसटीएम। और जिस कंपनी जी में आप जी पहला कंपनी जेटी टेलीकॉम, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, एरिक्सन में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। So I जी know each and everything how microwave antenna works, how यस ODU यस work, और indoor outdoor जो यूनिट होते हैं कैसे हाँ काम हाँ करते हैं, हाँ कैसे उसमें RF एंटीना के अंदर केबलिंग होती है, जी वो सब मैंने अपने हाथों से किया हुआ है और बहुत अच्छे से किया हुआ है। मैं बीटीएस एंड बीएससी इंजीनियर हुआ करता था एक क्लस्टर में, ठीक है। तो जी जेटी के जी अंदर बहुत सारे काम पे, तो आई कैन फील योर पेन्स, राइट। बट मेरे लिए भी एक बहुत एक सिचुएशन था कि मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो किसी ने मुझे एक ज्ञान दिया, मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वैसे ही मैंने एक सीनियर से उन्होंने बोला कि लाइफ में वो चीजें आज के डेट में ना प्रोग्रेसिव है जो समय के हिसाब से चल रही हूँ। तो उसने मुझे बताया कि आप पकड़ो प्रोटोकॉल्स, आप पकड़ो वो कॉन्सेप्ट जो अभी इमर्जिंग है। तो मेरे को उसमें बताया गया कि आप जाओ सीसीएनए करो, सीसीएनपी करो, सीसीआई करो, और आप सिक्योरिटी डोमेन में जाओ। तो मैंने अपनी लाइफ को 5-6 साल काम करने के बाद आई जस्ट चेंज माई इंटायर डोमेन। तो मेरा 5-6 साल मैंने काम किया और कंप्लीटली मैंने सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई ट्रैक पे चला गया। और उस दिन के बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और मैं आगे प्रोग्रेसिव भी होते जा रहा हूँ, डे बाय डे मैं टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते जा रहा हूँ। तो मैं भी आपको जैसे हर सर ने बताया आपको कि फायरवॉल्स एक ऐसी चीज है, नेटवर्क ऐसी चीज है, और सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है ना कि जहां भी आपके रिज्यूम में सिक्योरिटी मिलता है ना, थोड़ा अलग दिखता है, भीड़ से थोड़ा अलग हो जाते हो आप। तो पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट योर रिज्यूमे। तो वहां पे आपका एक तो वेल्थ भी सही रहता है, हेल्थ भी सही रहता है, और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास बहुत अच्छा एक नेटवर्किंग का, ये मत समझो कि आपको फील्ड का नॉलेज है तो वो कोई बेकार नॉलेज है। इट इज गोइंग टू गिव यू द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो लोग नॉन फील्ड में, जैसे कोई बंदा है जिसने सीधे सीसीएनए किया और जाकर ऑफिस में काम कर रहा है, और आपने फील्ड से आके सीसीएनए करके फिर आप ऑफिस में काम कर, दोनों के जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें अलग डिफरेंस होते हैं। क्योंकि जी आपने रियल डिवाइसेस देख रखे हैं, कैसे कनेक्ट होता है, कैसे केबल कनेक्ट होता है, कैसे फाइबर कनेक्ट होता है, जी जी कैसे मल्टीप्लेक्सर्स में फाइबर लगते हैं, कैसे उसमें राउटर से कनेक्शन आते हैं, वो सब देख रखा होगा आपने, जी जो जी बाकी लोगों ने नहीं देख रखा है। तो मैं जी आपको यही बोलूंगा कि यही राइट टाइम है, आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी सर्वर में आप काम कर रहे हो, जस्ट गो इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। चाहे वो अगर सर्वर में जाना, सर्वर इज नॉट लाइक बैड थिंग, आप सर्वर में भी आप करियर बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड होता है सर्वर में। लेकिन आप नेटवर्किंग सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी में जाते हो तो मतलब सर आपका सर अभी क्या। आप सर्वर में ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क में ज्यादा नेटवर्क और सिक्योरिटी में हम ज्यादा खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ये कहना पैसे भी चाहते हैं? पैसे भी ज्यादा हैं इसके साथ साथ। अच्छा, एक्सप्लोर भी कर मतलब सकते हैं कि और पैसे भी सर्वर में ज्यादा। हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, पैसे कम है, और हम नेटवर्क सिक्योरिटी में आते हैं तो एक्सप्लोर ज्यादा कर सकते हैं, पैसे ज्यादा है। एक्चुअली क्या है ना कि देखो सर्वर क्या है ना, देखो सर्वर क्या है कि उसमें आपके लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो डेटा सेंटर में कहीं कहीं लगे होंगे। हर कंपनी का क्या होता है कि जैसे डेटा सेंटर होता है, एक डेटा सेंटर होगा, 2 डेटा सेंटर होगा, ये होगा ना। उसमें हाँ हाँ कितने सर्वर रखोगे आप? 10 रख दिए, 20 सर्वर रख दिया आपने, जहां पे सारा कुछ आप स्टोर कर रहे हो। लेकिन आपके राउटर स्विचेस देखो, फायरवॉल्स देखो, जहां जहां उसके ब्रांचेज है वहां वहां लगे होंगे, और वहां वहां इंजीनियर चाहिए आपके, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। इसलिए सर्वर में हमेशा लिमिटेड जॉब्स होती हैं, और नेटवर्क सिक्योरिटी में हमेशा ज्यादा जॉब्स होती है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ फायरवॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपको डे बाय डे करना होता है। सर्वर्स में भी हाई स्किल्स जॉब ऐसा नहीं है बोलते हैं, लेकिन इन कंपेयर टू द सिक्योरिटी अगर बात करते हो तो कम है, नेटवर्क सिक्योरिटी के हिसाब से कम है। Yes, sir. ठीक है सुनील जी। तो सर जो मेरी एक्सपीरियंस है, एयरटेल में 3 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं सर्वर देख रहा हूँ, पहले मैं नेटवर्क भी देखता था हम्म पैन इंडिया का, क्योंकि यहाँ से जो मानेसर ऑफिस है यहाँ से पैन इंडिया देखते हैं हम लोग। हम्म तो मैं पहले नेटवर्क देखा, फिर उसके बाद से हमें पसंद नहीं आया तो मैं सर्वर की तरफ चेंज कर लिया टीम, और मैं सर्वर करंट में देख रहा हूँ पूरी पैन इंडिया का। तो आपका मतलब है कि सर्वर से ज्यादा मैं अगर इधर नेटवर्क सिक्योरिटी में आप आता हूँ एक्चुअली तो कर नेटवर्क सकते हैं। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में जो बात कर रहे हैं ना, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सब नीश टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब मार्केट में बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई डिमांड है इनकी, बहुत ज्यादा। अभी इनकी सैलरी पैकेज देखोगे आप ना, तो मतलब अगर आपको नॉलेज है, ट्रस्ट में 30-40 इज कॉमन थिंग्स नाउ इट इज। जिसको अगर सच में नॉलेज है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है जिसको, और आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर रहा है या कंसल्टेंट लेवल पे काम कर रहा है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडस्ट्री। अच्छी अच्छी कंपनियों में आप जिसका भी एसेंशियल का रख लो, आप
ऑरेंज का रख लो, आप SCL का रख लो, आप ठीक है, विप्रो का रख लो, आप ब्रिटिश टेलीकॉम का रख लो, ऐसी कंपनी की बात करते हो आप, तो वहाँ पे बहुत अच्छे पे आउट्स हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। जी तो मैंने साइड से AWS की क्लाउड भी मैंने पढ़ रखा है, तो क्या वो मेरे लिए यहाँ मैं पालो अल्टो पढ़ता हूँ, सिक्योरिटी पढ़ लेता हूँ, फायरवॉल पढ़ लेता हूँ, तो क्या क्लाउड सिक्योरिटी अलग है और एक क्लाउड अलग है? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल पालो अल्टो तो बिल्कुल। सिक्योरिटी हो गया देखो सर, सब लेकिन ऐसा AWS है तो कि क्लाउड हो गया। सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड हैं, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। पहले आपको ना एक रोड मैप अपने दिमाग को ना बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ेगा, मुझे करना क्या लाइफ में। जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो अगर आप बार बार डोमेन चेंज करोगे, ठीक है, तो आपके लिए ना मतलब नॉलेज तो बहुत सारा इकट्ठा होगा, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में एक होता है ना ग्रो होना, वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा जैसे आपको टेलीकॉम का नॉलेज हो गया, आपको नेटवर्क का भी नॉलेज होगा, आपको सर्वर का भी नॉलेज हो गया, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे मैंने टेलीकॉम में भी काम किया, मैंने नेटवर्क में काम किया, मैंने सर्वर में। आप जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाते हो आपके पास, तो आपसे एक ना एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट लेवल का एक्सपेक्टेशन होता है इंटरव्यूअर का, कि आप मेरे पास आए हो, मेरे पास ओपनिंग है फायरवॉल की, फायरवॉल इंजीनियर की, सिक्योरिटी इंजीनियर की, या क्लाउड इंजीनियर की, या फिर मैं सर्वर इंजीनियर की, तो आपकी उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अगर बोलते हो कि नहीं मैं क्लाउड इंजीनियर हूं, तो आप बिल्कुल क्लाउड परफेक्ट इंजीनियर, आपको पूरी क्लाउड टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। आप बोलते हो कि नहीं मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूं, तो आपको पूरी सिक्योरिटी इंजीनियर के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर बोलते हो कि मैं सर्वर इंजीनियर, तो पूरी सर्वर के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइमरी आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में अगर 100% आप क्लियर हो, फिर आपके पास एड ऑन स्किल्स हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है टू क्रैक द इंटरव्यूज। तो मैं ये बोलता हूँ एक्सपर्ट बनो, सारी चीजें इकट्ठा करनी अच्छी बात होती है, लेकिन एक चीज में एक्सपर्टीज रखना वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उसी के बेस पे ना आप इंटरव्यू क्रैक करके, कोई भी कंपनी हायरिंग करती है तो वो क्या करती है कि अपने स्किल सेट डिफाइन करती है कि मुझे इस स्किल्स के लिए मुझे पॉलो ऑल्टो एक्सपर्ट चाहिए। तो जब पॉलो ऑल्टो एक्सपर्ट चाहिए तो आपको पॉलो ऑल्टो की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो आपको कितना भी बोलोगे कि मैंने फायरवॉल सीख रखी है, मैंने क्लाउड सिक्योरिटी सीख, देखेंगे नहीं आपको। तो एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आपको रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाए पहले, फिर बाकी चीजें आप अपना एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए रख सकते हो। तो सर आप जो ट्रेनिंग देंगे हमें पालो अल्टो का, आपकी ट्रेनिंग और लैब जो आप हमें देंगे, उसके बेस पे क्या हम एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं कि पालो अल्टो पे हमने कितने दिन काम किए हैं? देखो क्योंकि दो चीज होती हैं। देखो अभी आपने बोला कि हाँ, एक्सपर्टीज होना जरूरी है, हाँ एक्सपर्टीज तो मतलब एक्सपीरियंस तो दिखाना पड़ेगा आपको। एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज कैसे आती है? जब आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते हो। ऐसे तो आएगी नहीं, जब तक आप काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे आएगी? तो जो जो हमारा सेशन होता है उसमें मैं आपको सारी चीजें टेक्नोलॉजी को पूरा मतलब डिटेल में बताऊंगा कैसे चलती हैं, सारी कुछ लैब करके आपको दिखाऊंगा। फिर आपके पास अनलिमिटेड 24/7 एक्सेस होगा लैब्स का। तो आप उस लैब पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास ऐसे एक्सपर्टीज आ जाएगी कि आपको सारी चीजें जब पता होगी, जब आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप कोई कार ड्राइवर एक्सपर्ट कैसे बनते हो, आपको बोला जाए कार ड्राइवर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या आता है, पहली तो कंडीशन है आपके पास कार एक होनी चाहिए, राइट? या फिर आप रेंट पे लेना चाहिए, कुछ तो करोगे ना आप। या तो आपके पास कार होनी चाहिए, या तो रेंट पे लोगे आप, फिर उसको आप क्या करोगे, आप उसको चलाना सीखोगे। तो जब आप बार बार चलाओगे 10 दिन चलाओगे, तो आप उसको चलाना सीख जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सिंपल सा बात है। इसे ट्रेनिंग में होती है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि आप ट्रेनिंग में चीजों को सीखते हो, आपको सिखाया जाता है। सिखाने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलोगे हाँ जी मुझे सारी चीजें आती हैं। तो आप रिज्यूम में आप इस तरीके से बताओ कि हाँ मुझे आती है, मैंने कर रखा है। अब इंटरव्यूअर को सामने वाला क्या पता है कि आपने किया है कि नहीं किया, झूठ बोल रहे हो सच में। लेकिन फायरवॉल जो कंपनी में आप काम करोगे, जो यहाँ पे काम करो, सेम ही फायरवॉल है। फायरवॉल तो सेम ही है ना, उस पर भी आप पॉलिसी बनाओगे, यहाँ पे पॉलिसी बनाओगे। तो अगर आपको पॉलिसी बनाने आता है तो आप बता सकते हो कि आई नो हाउ टू क्रिएट द पॉलिसी। आप कुछ क्वेश्चन पूछो मेरे से, यू कैन टेल कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो कैसे पॉलिसी बनता है। तो बंदा अपने आप क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसका आंसर करोगे तो वो खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है। पंकज कारपोरेट में कुछ अलग टाइप से बनेंगे और आप जो हमें लैब बताएंगे ये तो एक सिंपल सा चीज दिखाएंगे, लेकिन कारपोरेट में तो कुछ अलग टाइप से होगा ना सर। तो उसके लिए क्या आप कुछ देखो अलग से बताएंगे जो सुनील जी कॉर्पोरेट जो होता है ना, सुनील जी कॉर्पोरेट का नेटवर्क जो होता है ना। एक सेकंड, सॉरी टू इंटरव्यू। हाँ सुनील जी, जो आप कह रहे हैं ना, वो पंकज ने काफी टाइम खुद एक्सपीरियंस किया है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे हैं। जी जी एक्सक्यूज मी। अपने हर्षदीप सर भी हैं, उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे इफ ही प्लीजेस टू। बट वो है कि बेसिकली जब भी आप कहीं भी काम करने जाते हैं, वेदर इट इज कॉर्पोरेट, प्राइवेट, किसी फर्म में, किसी भी सेक्टर में, जी सर। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये जब आप इंटरव्यू में बैठ जाते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स अगर आपके पास 10 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका असर तो पड़ता है आपके रेज्यूमे में।
लेकिन अगर आपको मनूवर करना आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं घुमाना, ठीक है, तो फिर वो आपके रियल लाइफ मतलब किताबी थ्योरी आपके पास हार्वर्ड की डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको रियल लाइफ टर्म्स में डेली वर्क में नहीं उतार सकते। तो जब आप ये लैब जैसी चीजें करेंगे, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपका 24/7 जब आपको लैब का एक्सेस होगा और उस पर आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीजें करेंगे, तो किसी भी थ्योरी पढ़े हुए आदमी से, कोर्स किए हुए आदमी से आपका हैंड्स ऑन जो कंपनी को चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, वो एज आपका ज्यादा हो। पंकज यही कहना चाह रहे हैं। If I am correct me if I am wrong, पंकज। जी विशाल सर बिल्कुल सही बोला। तो मैं सुनील जी को ये बता रहा था, देखिए जो हम लैब करते हैं ना सुनील जी, ट्रस्ट में आपका 10% या 20% ही सिर्फ आपको, जितना मैं कराऊंगा ठीक है उतना मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, मुश्किल से 20% या 30% ज्यादा मैं बता रहा हूँ किसको आपको काम करने को मिलेगा, जितना मैं सिखाऊंगा उसका एक्चुअल रियल कॉर्पोरेट में। रियल कॉर्पोरेट में क्या होता है, लिमिटेड चीजें होती हैं। आपको मान के चलो कि आपको L2 इंजीनियर हायर किया गया, चलो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको L2 इंजीनियर हायर किया गया, तो L2 इंजीनियर के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि पूरा फायरवॉल बैठ कर पूरा कन्फिगर करे, पूरा नया फायरवॉल कभी कभी बनाने को मिल जाएगा, लेकिन आपको मेजर ऑफ काम क्या करना होगा कि आपके फायरवॉल पे आपको छोटी मोटी पॉलिसी बनाना, उस पर नया टूल खोलना, कुछ कुछ उसको मॉनिटरिंग करना, कुछ कुछ छोटे मोटे उसका iOS अपग्रेड कर देना, तो यही सब काम रहेगा। लेकिन हम लैब में क्या करेंगे, लैब में हम सारा कुछ पढ़ते हैं, एडवांस छोटी से लेकर बड़ी चीजें तक सब कुछ हम कवर करते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। तो आपके पास ट्रेनिंग में जब आप मॉड्यूल करते हो तो आपको पूरी चीजें पढ़ाई जाती है, आप कितना ग्रैप्स करते हो, कितना उसको रिकैप करते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपके पास रहेगा, लैब भी रहेगा, वो आपकी खुद की मेहनत होती है। लेकिन जो कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें, लिमिटेड एक्सेस होते हैं, लिमिटेड टाइप के आपको काम मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है कि आपको गए, आपको बोला गया कि कॉर्पोरेट में कि जी चलो 100 फायरवॉल आप लगा दो और इनके आपके बीच में इथर चैनल बना दो, इनके बीच में ऐसा कुछ डिजाइन आर्किटेक्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप टीम होती है, जो हर टीम का अलग अलग काम होता है और लिमिटेड स्कोप में हर टीम को अलग अलग काम मिलता है, हर चीज का एक्सपर्टीज सबके पास नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट का काम करना बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हाँ फायरवॉल आपको यही मिलेगी और काम करने का भी आपको वही मिलेगा। आपको यहाँ पे ज्यादा सीखने को मिलेगा, वहां पे आपको कम काम करने को सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको प्रोडक्शन में होगा, प्रोडक्शन में आप ऑन फ्लाई कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप फायरवॉल को रिबूट मार दो, कौन पूछने वाला है आपसे, कोई पूछेगा आपसे? कुछ नहीं, आपके लैब आप करो, लेकिन वहां पे आप मार दो तो अगले दिन आपको टर्मिनेशन लेटर, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो कॉर्पोरेट का जो हिसाब किताब होता है, आप मैं बोलता हूँ कि कई लोग L3 इंजीनियर होते हैं ट्रस्ट में, नेटवर्क के राउटर पे उनको एक कमांड चलाने का एक्सेस नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट टीम में जाने का एक्सेस नहीं होता है। आप मानोगे कि उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है उनको, समझ रहे हो? तो कॉर्पोरेट की बात ही मत करो, कॉर्पोरेट में सिनेरियो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वर्किंग हो, किस लेवल पे वर्किंग हो और कैसा आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है सुनील जी? सर आप जॉब असिस्टेंट में कुछ करेंगे? हाँ, जॉब असिस्टेंट में हमारे विशाल सर हैं। हाँ बताइए सर। उसी में पंकज, लास्ट वीक हम लोग मंडे को इसी की बात कर रहे थे, जो हमारा ऐसे ही ओपन फोरम डिस्कशन था जो हम करते रहते हैं बीच बीच में। तो उसमें हमने पूछा था सिर्फ जॉब असिस्टेंस ही नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस ही नहीं, प्लस इंटरव्यूज के लिए भी हमने एक मॉड्यूल का फीडबैक लिया था लोगों से, और सबका बड़ा पॉजिटिव था उसमें कि हाँ वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो हमने वो मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड अगले बैचेस से जो ये बैच शुरू होगा आप लोगों का, और इसके साथ और इसके बाद भी जो बैचेस शुरू होंगे, उनमें हम डेफिनेटली वो वीक में 1 से 2 डिस्कशंस ऐसे रखेंगे एट अ कॉमन टाइम। वो हम डिसाइड कर लेंगे जब सब अवेलेबल हो या मैक्सिमम लोग अवेलेबल हो, और उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे। तो बड़ा डाइवर्स वो बनाया है, क्योंकि उसमें टेक्निकल पार्ट पंकज हैंडल करेंगे, उसका जो टेक्निकल आपका इंटरव्यू होता है, बट जो बेसिक कम्युनिकेशन वाला होता है वो मैं और 1-2 लोग और हैं, वो लोग उसमें मैक्सिमम जितना भी हेल्प हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं 15-20 साल एक्सपीरियंस वाले हैं इंडस्ट्री के, तो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस का हेल्प हम सब लोगों को मिलेगा, और वही एजेंडा भी था पूरे मॉड्यूल को डिजाइन करने का। तो सुनील आपको, हाँ सॉरी सर, हो गया है, और हम अब एग्जीक्यूशन के फेज पे आ गए हैं कि नेक्स्ट बैच से हम शुरू कर दें। शुरू कर दें। जी सर।
तो सुनील जी हमारे विशाल सर हैं और अभिषेक सर तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, और भी हमारे पास संतोष सर हैं, अरुण सर हैं। सो हमारे पास पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है। सो आप लोगों को टेंशन नहीं होने वाले इन फ्यूचर, ठीक है। सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, आप लोगों को पूरा असिस्टेंट मिलेगा और तरीके सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप मैक्सिमम बिल्कुल असिस्टेंस टेंशन। हम प्रोवाइड कर हाँ, सकते हैं, वो हम आज डेफिनेटली भी आज करेंगे। भी आज भी हमारे पास 3-4 जॉब ओपनिंग है जो हमने स्किल सेट के लिए खोज रहे हैं। फ्रीलांसिंग का जॉब ओपनिंग हमारे पास है, मतलब, लेकिन हमारे पास स्किल सेट ही नहीं लाइनेक्स का, वरना मतलब ऑलरेडी जॉब अवेलेबल्स हैं, अभी यहाँ के नहीं, इंडिया से बाहर के अवेलेबल्स हैं। बट हमारे पास कोई हम, क्योंकि हम इसमें एनसिबल पे काम नहीं करते हैं, तो हम उसको फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बाकी चीजें तो हमने ऑलरेडी कई लोगों को प्लेस कराया है रिसेंटली। अभिषेक सर के पास एग्जैक्ट डेटा है, आप लोग उनसे बात करिएगा पूरा एससीएल में, विप्रो में कहाँ कहाँ उन्होंने कई लोगों को प्लेसमेंट कराया है। तो अभी किसी के पास अगर एनसिबल का अगर कोई एक्सपर्ट होगा और 2-4 घंटे काम करना चाहता है डेली बेसिस पे, तो आप लोग मुझे बताएं। इमीडिएट अवेलेबल ओपनिंग्स है, और बस जरूर सर। एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए, कंसल्टेशन के लिए बहुत अच्छा पे आउट है। लेकिन अब क्या करें उसको जो है हम थोड़ा इन सारी चीजों को ना थोड़ा सा अपना एक ब्लॉग बना के प्लेसमेंट असिस्टेंस का स्पेसिफिकली उसको हम थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रीमलाइन करके मेंटेन करेंगे, ताकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। उसके लिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, और आपके रेफरेंस में भी जो लोग हैं, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वेबसाइट हर लोग हर टाइम खोल के देखते नहीं है। ऐप का लिंक अभी शेयर कर दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने जो है रिव्यूज डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जैसा भी आपको लगता है। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ताकि हम उसको और बेटर कर सकें। और उसमें इस तरह की चीजें जो प्लेसमेंट असिस्टेंट से रिगार्डिंग है, प्लस इंटरव्यू से रिलेटेड है, हम रेगुलर पोस्टिंग्स उसमें करते रहें, ताकि सबकी जो है हेल्प हो सके। अच्छा, मैं अभिषेक, मैं कुछ कहना चाह रहा था जी। अगर अभी किसी को हैदराबाद लोकेशन पे L1 पोजीशन के लिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी ना, अगर कोई जाना चाहता हो L1 पोजीशन पे हैदराबाद लोकेशन, तो वो अपना रिज्यूमे हमें शेयर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग है, L1 है और L2 पर भी है, लेकिन L2 की लगभग बहुत कम आती है, बट L1 पर रेगुलर आती है। तो हाँ, L1 पे तो काफी आती रहती है, वहाँ ओपनिंग हमेशा रहती है। हाँ, तो वो अपना CV शेयर कर सकते हैं। और अरिहंत जी, इसके लिए कितनी होती होगी सर, कुछ आइडिया? सर एक सेकंड सर, अरिहंत जी बोल रहे थे ना अभी L1 L2 ओपनिंग के लिए। हाँ अरिहंत जी, आप एक बार ना अभिषेक जी से कनेक्ट कर लीजिए, और अपनी रिक्वायरमेंट जो है, जो भी आपके नॉलेज में है, उसको जो है डिटेल्ड रिक्वायरमेंट उससे शेयर कर लीजिए। तो आई एम श्योर कि अभिषेक जी के पास और भी पूल ऑफ हमारे पुराने जो है स्टूडेंट्स का होगा। सो वट एवर ही डीम्स फिट, हम नेटवर्क में अपने बात शेयर कर लेंगे, और उस तरह से कोलेट करके आपको एक साथ प्रोफाइल्स दे पाएंगे आपको। नहीं तो ऐसे इंडिविजुअली अगर आपको आते रहे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। श्योर सर। ठीक है, तो आप एक बार वो डाल दीजिए अभिषेक जी को, आई एम श्योर आपके पास नंबर होगा, या आप हमारे नंबर पे ही डाल दीजिए GuiNet टेक्नोलॉजीज वाले में। तो अभिषेक जी उसको टेक ओवर करके आपको जो है कलेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, ये जो हमारी GuiNet टेक्नोलॉजी है ना, उस नंबर पे है, जो उसी नंबर पे शेयर करा दें, सब लोग शेयर कर दें, मैं उनको चीजें अवेलेबल करा दूंगा। जी ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में क्वेश्चन है, बताइए। हमारा ट्रेनिंग का टाइम और कितने टाइम ड्यूरेशन होंगे, और सर स्टार्टिंग पैकेज क्या होंगे, कुछ आइडिया सर? बट टाइमिंग का तो देखो, टाइमिंग तो मंडे टू फ्राइडे सेशन रहेगा, बट हम 4 दिन ही क्लास करेंगे, ठीक है। एक दिन हम छुट्टी कर देंगे, या तो फ्राइडे को करेंगे या तो किसी दिन कर लेंगे, ठीक है। 4 दिन ही क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, 5 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है। पहली बात बहुत क्लियर है। मतलब सैटरडे संडे तो पक्का छुट्टी रहेगा। हाँ, सैटरडे संडे रहेगी छुट्टी, बीच में एक और छुट्टी आप लोग को मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा आप लोग को फीडअप हो, जल्दी से मैं खत्म करके आप लोग को बोलूँ कि जी काम खत्म हो गया। नहीं, आप लोग भी रिलैक्स हो, ओपन डिस्कशन करें, हाँ अपने हाँ एक्सपीरियंस शेयर हाँ, करें। मतलब एक क्लास ऐसा रहेगा कि जिसमें हम मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, या जो भी करना हो कर लेंगे, ठीक है। कुछ डाउट सेशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो 4 days इन ए वीक आपकी सेशन होगा। एक बात 7 to 8:30 फिक्स टाइम है, +- 15 मिनट मान के चलिए, कभी कभी हो जाए कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम कहीं फंस गए, सो +- 15-20 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। जी हाँ जी। एक मिनट सालेस, एक मिनट। और रही बात की दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका, कि स्टार्टिंग पैकेज, राइट? यस सर। स्टार्टिंग पैकेज, देखो स्टार्टिंग पैकेज तो हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी का भी, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कोई हमारे पास फ्रेशर आता है, राइट? सो फ्रेशर का एक पैकेज सैलरी एक्सपेक्टेशन अलग होता है, और एक एक्सपीरियंस आते हैं, एक मिड लेवल, एक एक्सपर्ट आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। जैसे कोई बहुत CCI बंदा हमारे पास आया,
उसको ऑलरेडी CCIE में सर्टिफिकेशन है और ऑलरेडी 20 लाख के पैकेज पे 30 लाख के पैकेज पे है, अब उसको किसी रीजन से पॉलो आल्टो फायरवॉल सीखना है, राइट, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो पॉलो आल्टो फायरवॉल सीख कर फिर वो किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं CCIE प्लस पॉलो आल्टो फायरवॉल, तो बट नेचुरल उनका उस करंट पैकेज पे उनका हाइक होगा, राइट। तो वो 30 है ऑलरेडी, तो उनका 40 होगा या 45 होगा, या 20 है तो 25 होगा, 30 होगा, या 10 है तो 15 या 20 होगा। लेकिन कोई बिल्कुल फ्रेशर आता है, राइट, कोई फ्रेशर आता है तो उसका तो कोई पैकेज ही नहीं है, तो स्टार्टिंग कंपनी तो पैकेज वही आपको पता ही, अराउंड 3 लाख एनुअल CTC मिलता है। अच्छी कंपनियां ही दे रही हैं आपको, छोटी हैं तो और कम देंगे आपको, तो इस तरीके से स्टार्ट होता है। अगर कोई किसी का ऑलरेडी 5 या 7 या 8 का पैकेज है, जिसको नेटवर्क आता है, जैसे आप सर्वर आपको आता है, राइट, और आप पॉलो आल्टो सीखते हो, तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वंस यू क्रैक द इंटरव्यू, तो जो भी आपकी करंट सैलरी होती है, जो स्टैंडर्ड हाइक होता है 30 से 35 से 40% होता है। लेकिन अगर आपके पास आज के मार्केट में क्या ट्रेंड बना हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि एक इंटरव्यू क्रैक करते हैं, एक ऑफर लेटर लेते हैं, फिर वो दूसरे में जाके अप्लाई करते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर उसमें बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो कई बार लोगों को 100% 200% हाइक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं, हर कोई नहीं होता है। तो सुनील जी, डिपेंड करता है कि आपकी करंट CTC क्या है, करंट एक्सपीरियंस क्या है, और कितना आप अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो। बट मिनिमम इज 30% आपका करंट CTC पे हाइक मिल जाएगा, क्योंकि आप वो तो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री हो। स्टैंडर्ड है। हाँ, बस उतना उस पे मिल भी जाएगा। डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में नेगोशिएट कितना अच्छा करते हैं। हाँ, नेगोशिएट इतना चेक न करते हो आप। हाँ जी, सर शैलेश जी बताइए। एक मिनट। सर टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम था मुझे, इसलिए मुझे भी हाँ, प्रॉब्लम है सर, 7 से नहीं 7:30 से कीजिए ना। सर 7:30 तो मुझे 8 बजे के बाद से फ्री हो पाऊंगा। अच्छा, एक काम करिए, आप लोग अभिषेक सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी जी। टाइमिंग का अगर आधे घंटे 15 मिनट का होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज्यादा होगा तो फिर वो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा, कि कई लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट करा चुके हैं, सो मतलब फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो विल सी कैसे, एक बार अभिषेक सर अच्छे से गाइड कर देंगे कि क्या बेटर हो सकता है। 15 to 30 मिनट्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो लेट्स सी कि कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो शैलेश आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? अभिषेक सर सर मुझे बता देते हैं। आ रही है, क्योंकि सर 7:30 मैं हो जॉब जाती करके आते वक्त घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाता है। सर आप अभिषेक जी से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू वर्क हाँ, समथिंग आउट। मतलब आप दोनों लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए एक बार, फिर विल सी कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके सर। तो लाइव एक्सेस तो कितना मंथ में मिलेगा? तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही अभी अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, आपको लाइव एक्सेस मिल जाएगा। लाइव एक्सेस मतलब कोर्स खत्म होने के बाद कितना दिन तक आप लोग मतलब जारी रहते हो? देखो, 2 महीने तो कोर्स हमारा है ही है, कहीं नहीं गया, ठीक है। 2 मंथ तो हम मिनिमम हम मतलब मान के चले कि लैब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर ओके आपको लगता है कि 2 मंथ बाद भी आपको लैब एक्सेस चाहिए, तो 15 डेज बाय डिफॉल्ट हम देते हैं। 15 डेज आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करना अभिषेक सर से। हम इतने रूड नहीं है, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप कर ओके। लोगे, इतने लैब मिलेगा कि आप कर लोगे, कोई नहीं देता जितना हम लैब देते हैं, क्योंकि हमारे पास लैब की कोई दिक्कत है नहीं ऐसी और हमारे पास। इसका वीडियो एक्सेस कब तक मिलता है सर? वो जैसे ही क्लास, जैसे आप अभी क्लास हुआ, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, कल एक्सेस मिल जाएगा आपको इस वीडियो का। नहीं एक्चुअली 1 ईयर्स का जो रहता है ना ये वीडियो का। और लाइफ टाइम, हमारा लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम। 1 ईयर का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। आपकी वीडियो है, आपकी लाइफ टाइम है, आप कभी भी देख सकते हो, आप ऐसा उसके कुछ लिए नहीं ही है। हम कह रहे थे कि अब हमने ऐप जो है अपना लॉन्च कर दिया है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां आपको मतलब हाथ हाँ, में ही, मोबाइल में ही सारा कुछ एक्सेस मिल जाएगा। ऐप पे आप वो जो जाओगे तो सर एनसिबल का जो आप बता रहे थे, हाँ मैं लिनक्स भी किया हूँ, तो अनसिबल हाँ, नहीं किया था। तो उसके पहले वो RSC मैं आपको ना RCSS। अभिषेक सर को बोल के ना जॉब डिस्क्रिप्शन भिजवा देता हूँ, एक बार आप देख लेना। अगर आपको मैच कर रहा हो तो एक बार आप, फ्रीलांसिंग का जॉब है, यूके बेस एक कंपनी है। एक हमारे ही कलीग हैं, हमसे ट्रेनिंग लिए थे, मतलब ही इज वेरी एक्सपर्ट। उनको मैंने SD-WAN ट्रेन किया था, 2 SD-WAN वर्सा का और सिस्को का। तो काफी अच्छे हमारे होता ना, एक रिलेशन बन जाते हैं कई लोगों से। तो मैंने उनको 1-to-1 ट्रेनिंग कंडक्ट किया था। ही इज वेरी गुड, आर्किटेक्ट रोल पे हैं। सो वो उनका ही जस्ट आया था कि आई नीड अ पीपल, अगर किसी को जानने वाला हो तो मेरे को चाहिए, मतलब। तो वो खुद ही कंसल्टिंग का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत ओके सारे लोग हैं US में, UK में, जो बार बार आते रहते हैं, कुछ कुछ मांगते रहते हैं। तो जितना हम हो सकता है करते हैं, नहीं होता है तो हम कहाँ से करें, फिर तो हम हाथ खड़े कर देते हैं। बट वी ट्राई ऑलवेज कि हमारे जो लोग हैं उनको पता चल जाए, ठीक है। मैं आपको ओके। भिजवाता हूँ, अभिषेक सर भेज देंगे आपको, ठीक है। ठीक है सर।
Okay, so I believe idea was to just finish the session by 7:45 ताकि मैच लोग देख लें, लेकिन काफी मैच से ज्यादा इंटरेस्ट फॉलो टू फायरवॉल में है, तो थैंक यू सो मच गाइज। हाँ जी बताइए। दिस इज अ करियर सर। ठीक है, थैंक यू दिनेश। हाँ देवाशीष आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था, एक्चुअली अभी मार्केट का ट्रेंड मतलब कैसा चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लॉट ऑफ कंपनी, मतलब बहुत सारे कंपनी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल पूछ रहे हैं। अभी मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मोस्टली इनटू राउटिंग एंड स्विचिंग। तो अभी क्या मतलब जैसा राउटिंग स्विचिंग, दे आर आस्किंग वायरलेस सिक्योरिटी दिस थिंग्स, सो डाटा सेंटर, तो ये सब में मतलब स्ट्रीमलाइन करना डिफिकल्ट हो जा रहा है। मतलब कोई कंपनी पूछ रहा है, कोई कंपनी नहीं, ऐसा। तो अभी देखो मैं जिस प्रोजेक्ट में मतलब जिस कंपनी में आया हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी और वायरलेस का थोड़ा रिक्वायरमेंट है, तो फिर से मैं उसके लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो और कोई दूसरा कंपनी फिर से जाऊंगा, वो उसका अलग रिक्वायरमेंट होगा। मतलब देखो देवाशीष जी, मैं आपकी बिल्कुल 10+ एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपसे मतलब आपसे नहीं, जितने भी 10+ डबल डिजिट वाले एक्सपीरियंस वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का, और जिनका पैकेज भी मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है, मेरा मेनली राउटिंग एंड स्विचिंग है। हाँ, मैं SD1 में वर्षा में ले रहा, उसको ले रहा हूँ आपको ये सर का, सर का। तो मेरा मेन कोर कंपिटेंसी है लैन वैन। तो मैं जो समझ भी गया। जो भी जहाँ पे सिक्योरिटी का काम, कहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज काम रहता है, तो वहाँ पे हम हैंडल करते हैं वो भी। पर अभी मतलब ऐसा 10+ ईयर्स में सिर्फ सभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहने से नहीं होता। तो वही उसका क्या करना है, मतलब इसका मैं आपको राइट एडवाइस राउटिंग। देता हूँ। देखो, आपको राउटिंग स्विचिंग बहुत अच्छे से आती है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। आपने ऑलरेडी माइंड सेट कर रखा है कि SD-WAN मुझे वर्षा करना है, दैट्स वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। तो एटलीस्ट वर्षा के साथ साथ सिस्को किया था क्या आपने मेरे नहीं, से? सिस्को नहीं किया था, पर अच्छा मैं बाहर पहले किया था विप्टेला का। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर विप्टेला आपको आता है और वर्षा आप सीख लेते हो, तो राउटिंग स्विचिंग प्लस वर्षा प्लस विप्टेला, सिस्को दोनों, तो ये एक अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यू कैन सर्वाइव वेरी इजिली इन द नेटवर्किंग डोमेन, ठीक है। अगर इतना चीजें आती हैं तो मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। हो सकता है कि जो करंट कंपनी है या कंपनी चेंज करोगे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो स्किल्स में, लेकिन ऐसा है कि आप इजिली सर्वाइव कर जाओगे क्योंकि SD-WAN आपको आता है। क्योंकि आज की डेट में जिसको राउटिंग स्विचिंग सिर्फ आती है, SD-WAN नहीं आती है ना, तो उसके लिए चैलेंजिंग है। जिसको SD-WAN आता है वो इजिली सर्वाइव कर ले रहा है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि SD-WAN इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डोमेन। हर किसी की बस की बात नहीं SD-WAN सीख लेना, ठीक है। बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत चैलेंज आता है SD-WAN, मतलब इट्स वेरी, मैंने इस पे काम किया है, मुझे पता है, और आज भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और दिमाग में सारी चीज रखना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो बहुत सर्वाइवल आप मतलब 30 लाख सिटी से तक बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट द मार्केट ट्रेंड इज कि लोग ना मल्टी स्किल्स खोज रहे हैं आजकल। खोजते क्या है कि अब देखो फायरवॉल में भी कई सारे फायरवॉल्स हैं। आप कोई खोजता है, किसी कंपनी में जाओगे तो आप ASA लगा होगा, किसी में जाओगे तो आप चेक पॉइंट मिलेगा, किसी में जाओगे तो FortiGate मिलेगा, किसी में जाओगे तो आपको पालो अल्टो मिलेगा। अब आप सारे फायरवॉल तो सीख नहीं सकते ना, सारे फायरवॉल तो सीख नहीं सकते ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि बीइंग ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इनमें से कोई एक अच्छे से सीख लो, चारों में से कोई एक अच्छे से सीख लो। और ऑलरेडी आप बोलते हो कि मेरे को WLC भी थोड़ा बहुत आता है, वायरलेस भी आता है, जो बहुत अच्छी चीज है, जो बहुत ही अच्छी चीज है, जिसको राउटिंग स्विचिंग वायरलेस SD-WAN आता है ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो हॉटकट कॉम्बिनेशन है एक नॉक इंजीनियर के लिए, एक इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर के लिए। तो इसके साथ अगर एक फायरवॉल सीख लेते हो ना, तो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर कोई फायरवॉल नहीं सीखना चाहता है तो F5 सीख लो, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। F5 भी नहीं सीखना चाहते, ये भी नहीं सीखना तो ZScaler सीख लो, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट ये सब ऑप्शनल है। नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैं बोलता हूँ कि पहले फोकस करो राउटिंग स्विचिंग अच्छे से, SD-WAN अच्छे से, और WLC अच्छे से। ये 3 चीज अगर आपको अच्छे से आती है तो कोई एक ऑप्शनल चीज सीख लो। अब देखो, पढ़ाई की तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है, और प्रोजेक्ट की भी लिमिट नहीं है, तो वो बड़ा वर्सेटाइल है, डोमेन बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल है। आप आज आप SCL में हो, कल आप विप्रो में जाओगे तो आपको हो सकता है कि वहां गए और आपसे क्लाउड पे काम दे दिया गया, क्लाउड पे काम करो जी। अब आपको क्लाउड आता नहीं तो सीखना ही पड़ेगा ना, तो यू हैव टू रेडी टू लर्न।
ये आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है आपको इसमें से स्किप आउट होने का, तो ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने भी क्लाउड की सर्टिफिकेशन किया, Zscaler की है, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके साथ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो हमारे पास डिमांड आते हैं कि हम पढ़ते गए, पढ़ाई तो बंद ही नहीं होना है कभी प्राइवेट में, ठीक है। तो बस ऐसे है, तो उसके लिए तो रेडी रहना है। बट हाँ ठीक है, जो वो आपके तो पास है। स्किल्स है उस पे आप बढ़िया से फोकस करो, उसको पॉलिश करके रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है सर। ये आप ACI का दे रहे हैं क्या, मतलब डाटा सेंटर? ACI नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें लैब की मेरे पास ना अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ACI की लैब करना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी जो लैब है हमारे पास और जो बैचेज हैं उसी को मैं एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ। बट द प्लान इज कि ACI डेटा सेंटर मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा। अब कितने दिन में लॉन्च करूंगा, जल्दी का मतलब कि 1 मंथ, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन मैं लॉन्च जरूर करूँ डेटा सेंटर, क्योंकि लैब बन जाएगा। बस थोड़ा सा अभी एक थर्ड सर्वर हम लेने जा रहे हैं, जैसे ही मेरे पास थर्ड सर्वर आ जाएगा ना, तो फिर विल ट्राई टू डिप्लॉय द ACI डेडिकेटेड, फिर हम उसको करेंगे। क्योंकि पॉलो ऑल्टो हमने एकोमोडेट कर लिया, हमने वर्सा कर लिया, हमने बाकी फायरवॉल कर लिया, बस अब उसके लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रा चाहिए जिसमें हम पूरा ACI का ही कर रहे हैं। तो वी आर प्लानिंग, तो जैसे ही, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है तो थोड़ा पैसे भी चाहिए, तो एक बार इंफ्रा बिल्ड हो जाएगा तो वी कैन स्टार्ट। क्योंकि बिना इंफ्रा के कैसे आप कराओगे, दिक्कत है ना कि आप थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकते ना, आपको लैब तो करानी ही पड़ेगी। तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। सो विशाल सर हैं, अभिषेक सर हैं, दे आर प्लानिंग, बहुत जल्दी ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जब एक बार चीजें आ जाएंगे तो फिर विल स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में रिसोर्सेज हैं, ट्रेनर्स हैं और हम भी हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं हमारे लिए भी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो आई बिलीव वी आर गुड, ठीक है फॉर टुडे, ठीक है गाइस। सो विल कनेक्ट वेरी सून, प्रोबब्ली अगले क्लास की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग को विजय सर भेज देंगे, ठीक है। विशाल सर कुछ बोल रहे थे आप? आई थिंक आई हैव डन बस फ्रॉम यही माय कह रहा साइड। था कि जो हमारा इंटरव्यू असिस्टेंस वाला जो हम शुरू कर रहे हैं या कम्युनिकेशन वाला शुरू कर रहे हैं, दैट इज ओपन टू ऑल, सो नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच कि किसी ने एनरोल किया हो हमारे क्लासेस के लिए तो वही आ सकता है उस सेशन में। एनीबडी हु थिंक्स दैट वी कैन हेल्प देम आउट इज मोर देन वेलकम टू जॉइन एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड गेन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंसेस। सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई हैव, जो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि डाउनलोड द ऐप, वहाँ आपको इजी एक्सेस होगा हर चीज का, एंड रिव्यू इट अकॉर्डिंगली। और कोई सजेशंस हो तो प्लीज शेयर कीजिए हमसे, कुछ भी, सिर्फ ऐप के लिए नहीं, वेबसाइट पे, कोर्स वर्क में, मीडियम ऑफ डाउनलोड, इंस्ट्रक्शन पे, अगर फीडबैक्स हेल्प्स अस बिकम बेटर। सो जैसे जैसे आता रहेगा हम वैसे वैसे इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे कलेक्टिवली उसको डिस्कस करके हमारी टीम में। बट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, अपने जो है साथ के लोगों को भी कहिए, देखिए उस पर, मतलब उसमें बहुत सारा मटेरियल है और भी हम डालेंगे। यस, हो सके उससे कोर्सेज तो ओके, हम थैंक उसमें तो कोई शक है ही, बट उसके अलावा जो चीजें हैं जिससे सबका हेल्प हो सकता है, उसके लिए आई डोंट थिंक, मतलब हम वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भैया हमारा आप इनरोल करेंगे तभी आपको मिलेगा। जो जेनरिक चीजें हैं वो वैसे भी हम कर ही रहे हैं, उससे अगर कोई हमारे साथ इनरोल नहीं है उसकी भी हेल्प हो सकती है। वी आर मोर देन हैप्पी इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग फर्दर। नो सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो विल डिस्कस मोर इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग इन टाइम। थैंक विश यू, यू वेरी गुड थैंक यू, इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। Just give me good Very good evening, good evening. evening, very good evening, Saurabh. How are you? All good? I'm fine. How about you? All good, all good. Thank you. Thank you. All right, so we all set. Just wait 1 more minute, then we'll start. All right. I can see already 14 people join. Let's see, 2 people more join. जरा सुपली चहा कसं घालायचं शिकव ना. All right, so let's start. So first of all, I would like to, welcome you all in the GuiNet technologies, right? And we are going to officially start the Palo Alto Firewall session from today.
The class is originally planned for the Hindi and English both, but I would like to understand because today is like open session. Anyone here who not understand in Hindi or not understand Hindi correctly, or if anyone here not understand Hindi, then probably we can talk in English. But if all are comfortable in Hindi, then we can talk in Hindi, English both. So Just let me know. any language preferences for anyone? That's what PK sir is asking. Yeah. Because Anyone in open session. With the language, English Hindi mix, like we normally talk. Continue with the language. All right, thanks Vishal sir. So let's continue in the Hindi English both. Okay. If anyone feel like yes, Sumit, you're saying something. Hello, Sumit. No, sir. Okay, I just muted you. I was thinking you were saying something. All right. So चलो हम start करते हैं. Okay. So I know you guys already joined my previous session. आप लोग में से काफी लोगों ने ज्वाइन किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट फायरवॉल क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ फायरवॉल्स. हमने कोर्स करिकुलम हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्लास. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज ऑल थिंग्स. हम क्यों पालो आल्टो फायरवॉल यूज करते हैं, राइट? क्यों इसकी रिकमेंडेशन है मार्केट में सबसे ज्यादा, हर जगह पालो आल्टो फायरवॉल की जो ओपनिंग्स हैं क्यों ज्यादा हैं, राइट? सो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, सारा हमने कंपेयर भी कर चुके हैं. पालो आल्टो फायरवॉल के बारे में भी हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बट स्टिल अगर आप लोग को किसी को लगता है कि आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, राइट, और इसके बारे में ब्रीफ मतलब कहीं पे कोई दिक्कत है तो जस्ट लेट मी नो, प्रोबब्ली आई विल कवर इट. एल्स व्हाट आई विल डू, मैं बिल्कुल आप लोग को डे 1 का जो बेसिकली पालो आल्टो फायरवॉल है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, राइट, कोर कॉन्सेप्ट, राइट. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स, लाइक कि अगर आपको कोई नया फायरवॉल दे दिया जाए, लेट्स सपोज समवन गिव यू द ब्रांड न्यू फायरवॉल टू यू, how you are going to configure. So we'll start from here. It's not like in module 1, but हम यहीं से start करेंगे and we'll try to explore each and everything because basic fundamental बहुत clear होना चाहिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है. Guys, okay. So basically what we can do, we can discuss in very detail. बिल्कुल जीरो से. हाँ जी बताइए सत्या. सर जीरो से शुरुआत कीजिए, मैं भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है. ओके थैंक्स मदन. बताइए सत्या. सर ये बोल रहा था कि जैसे कि हमें कोई नया राउटर हमारे फायरवॉल मिल गया तो किसी भी कंपनी का, तो ये मिलने से ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कंपनी वाला जो क्लाइंट हमारा रहेगा या कंपनी जो रहेगी, अगर हमको उनके हम एम्प्लॉय हैं तो हमको फायरवॉल देगी, उसको इंस्टॉल करना है, कमिश्निंग करना है, कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन उसके ऊपर वो अपना एक शीट देगी ना कि मुझे रिकमेंडेशन, हमको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस टाइप से कुछ नोट्स देगी ना वो, मतलब रिक्वायर्ड के अनुसार कि आपको ये करना है. एक्चुअली होता क्या है कि दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, राइट सत्या. सो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, राइट, सो कंपनी एक्चुअली क्या होता है कि उनकी प्री डिफाइंस कुछ डिवाइस मॉडल्स होता है, राइट, कि आपको राउटर कौन सा मॉडल का लगाना है, राइट, आपको स्विच कौन सा मॉडल का लगाना है, आपको फायरवॉल कौन सा मॉडल का लगाना है. तो ये सारी चीजें प्री डिफाइन होती है. ये प्री डिफाइन कौन करता है? जैसे कि जो एंट्री लेवल के इंजीनियर होते हैं वो नहीं करते हैं. मीन्स आई मीन एंट्री लेवल के इंजीनियर मीन्स कि L1 या L2 या L3 भी नहीं करते हैं. ये सब काम करने के लिए कि हार्डवेयर कौन सा लगेगा, इसके लिए आपके कंपनी में बेसिकली आर्किटेक्ट होते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आपके यहाँ डिजाइनर होते हैं. दे डिजाइन योर नेटवर्क. सो उनका रोल ये होता है कि दे डिजाइन नेटवर्क कि भाई कौन सा डिवाइस किस ऑफिस में लगना चाहिए. सो वो आपके पास एक जिसको बोलते हैं LLD, लो लेवल डिजाइन, राइट, और एक होती है HLD जिसको बोलते हैं हाई लेवल डिजाइन. सो ये जब आप लोग धीरे धीरे आगे जब जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस होते जाएगा तो आप लोग का एंड गोल यहीं पे आके जो बेसिक जो कीज है ना, जहाँ पे हाईली स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत होती है, वो जब LLD आप बनाते हो, HLD बनाते हो, तो यहाँ पे आपकी सारी स्किल्स की जरूरत होती है. जब HLD LLD बनती है इसके अंदर हर एक चीज लिखी होती है कि आपको कौन सा फायरवॉल का मॉडल यूज करना है. तो लेट्स सपोज कि आपको डिसाइड हो गया कि आपको पालो आल्टो फायर, ऐसा सबको लग रहा है कि किसको लग रहा है?
वॉइस ब्रेक हो थोड़ा रहा है सा मेरा। स्क्रीन में कुछ इश्यू आ रहा है हाँ थोड़ा सर, हाँ सर, आपका आवाज थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, लेटेंसी। अभी होना शुरू हुआ है वॉइस में, लेकिन थोड़ा स्क्रीन भी अजीब सा दिख रहा है, मतलब पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है ढंग से। ओके, भी सही आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लेटेंसी सही दिख रही है मुझे। अभी नहीं नहीं, आवाज आ रही है। वॉइस ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा ना जूम पे रेजोल्यूशन में इश्यू हो रहा है। एक बार अगर आप स्टीयरिंग किसको शॉप और भी किसी को स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है या नहीं सिर्फ नहीं सर, विशाल सर को नहीं? मुझे ठीक, मुझे तो शो हो रही, ठीक है। पे थोड़ा सा सही है सर, स्क्रीन सही है। एक बार स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयरिंग शुरू करें तो आई गेस इट वुड बी परफेक्टली ओके, फाइन। लेट मी डू दैट, मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ लेट मी ठीक नो। है, ठीक है, थैंक यू। सो द आइडिया वाज कि लाइक जब भी आप मतलब नेटवर्क डिजाइनर बनते हो या मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हो, तो वहाँ पे होता है क्या है कि आपको प्री डिफाइंस फायरवॉल्स मिलती हैं कि आपको ये मॉडल ऑफ द फायरवॉल लगाना है। तो लेट्स सपोज कि आपको पालो अल्टो फायरवॉल मिल गया कि आपको पालो अल्टो फायरवॉल अपने नेटवर्क में लगाना है, राइट? सो जब आपको पालो अल्टो फायरवॉल मिल गया तो उसका एक मॉडल ही मिलेगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कौन कौन से पालो अल्टो के मॉडल्स होते हैं, जो एक एक करके मैं बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा मतलब मॉडल किस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। तो मान के चलो सबसे स्मॉलर फायरवॉल होता है 220। ये जब मॉडल आपको मिल जाता है पालो अल्टो फायरवॉल का, तो अब आपको कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन कई तरह की हो सकती है। सॉरी टू कॉन्फ़िगरेशन कुड इंटरप्ट बी सर, लेकिन लगता है स्क्रीन दोबारा से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे पहले था वैसे फिर से होगा। किसी और को भी यही इशू आ रहा है स्क्रीन में? नहीं, क्लियर आ रहा है। स्क्रीन क्लियर है, आप थोड़ा ठीक अपना है ठीक है, देन यू कैरी ऑन। सॉरी, थैंक यू। सो लेट्स से सपोज कि जो PA220 हमारा एक फायरवॉल है, सो दिस फायरवॉल इज लाइक बेसिक फायरवॉल ऑफ द लाइक एनी पालो अल्टो नेटवर्क। सो इसकी कई तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या हो सकता है कि आपको बोला जाए कि ये ब्रांड न्यू फायरवॉल है, इसको आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। तब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैं आप लोगों को एक चीज करके बताऊंगा, या कुछ इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। एडवांस में क्या होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ डिपेंड करता है, या कुछ कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ सकता है, राइट? तो ये कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका कैसे बेसिकली पालो अल्टो बिल्कुल ब्रांड न्यू फायरवॉल है, राइट? तो आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे आपको राउटर दे दिया जाए तो आप उसके साथ पहली बार आपको मिलेगा राउटर, तो आप उसके साथ क्या करोगे, कैसे उसको बेसिकली ट्राई करोगे उसके साथ खेलने के लिए। जैसे आपको एक नया मोबाइल खरीद के दे दिया गया, तो आप कुछ तो करोगे इस मोबाइल के साथ, आप पावर ऑन करोगे, उसके बटन पे क्लिक करोगे, कुछ तो कुछ करोगे। तो वैसे ही आप समझो कि एक तरह से आपका एक न्यू प्लेइंग टॉय है, टेक टॉय है, राइट? तो उसको कैसे खेलोगे, क्या उसमें कैसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, कैसे उसको डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे कुछ उसके अंदर नया कॉन्फ़िगरेशन डालोगे। जैसे मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल करते हो अपने नीड के हिसाब से, तो वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो सत्यम, जो आपका क्वेश्चन था सत्य, आई बिलीव कि जो कंपनी में जब जाते हैं तो आपको क्या डेटा मिलता है। तो डेटा आपको प्री डिफाइन पहले से मिलेगा कि फायरवॉल कौन सी लगाना है। अब फायरवॉल लगाना है तो आप लगाने के साथ, जैसे मान के चलो कि आप फील्ड इंजीनियर हो, आप गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फायरवॉल लगाने से पहले आपको क्या प्री रिक्विजिट, क्या पहले चेक्स करना चाहिए। उसके लिए कितना रैक यूनिट होना चाहिए रैक के अंदर, राइट? कितना वो जगह लेगा फायरवॉल। जैसे फायरवॉल लगाओगे तो उसको कहीं रैक में लगाओगे ना, जैसे रैक ऐसी होती है। तो यस आपको सर, यस दिखाता सर। हूँ कुछ, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, बट लेट मी जस्ट शो यू कि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल जाए। सो अगर आप अगर आप नेटवर्किंग रैक्स देखते हो, सो कुछ इस तरीके के रैक्स होते हैं, ठीक है? देखो इस तरीके के रैक्स होते हैं, तो जी सर, इसके अंदर देखा आपको हुआ। फायरवॉल इंसर्ट। तो ये 1 RU का होता है, मींस 1 रैक यूनिट होता है। 2 RU का होता है, 2 रैक यूनिट होता है। तो डिपेंड करता है किस, और मल्टीपल RU भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी फायरवॉल की साइज क्या है। तो जो छोटी फायरवॉल होती है बेसिकली 1 RU या 2 RU आती है। जो बड़ी बड़ी फायरवॉल होती है उसमें ज्यादा रैक यूनिट की जरूरत होती है, हो सकता है कि आपका हाफ रैक वो ले लें। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी रैक यूनिट लेती है। फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि जो डिवाइस आपने लिया है उसको कितना पावर सप्लाई चाहिए। जब तक आप उसको, जैसे आपका कोई एक, जैसे आपके घर में माइक्रोवेव होगा, राइट? आपके घर में एक आयरन प्रेस होगा, आपके घर में गीजर होगा, AC होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आपने
कोई भी आपने पावर सप्लाई दे दी तो वो चल जाएगा, उसके लिए प्री डिफाइंड पावर वॉट्स होते हैं, जैसे 2 किलो वॉट्स, राइट। सो आप अगर 2 किलो वॉट्स का सप्लाई दोगे तभी आपका एयर कंडीशन चलेगा। अगर आपका गीजर है 3 किलो वॉट का आप सप्लाई दोगे तभी आपका गीजर वाटर को हीट करेगा। आपका माइक्रोवेव है तो अगर 1 किलो वॉट का उसको सप्लाई दोगे तभी आपका माइक्रोवेव ओवन में खाना बन पाएगा, राइट। सो हर चीज का एक पावर मेजरमेंट होता है। तो इस तरीके से हर एक फायरवॉल की एक अपनी स्टैंडर्ड पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पावर की डेटा सेट जो होती है हर डिवाइस की, उस पे मेंशन होता है कि कौन सी फायरवॉल कितनी पावर चाहिए। तो उतने पावर सप्लाई भी आपको इस फायरवॉल को अपने पीएससी यूनिट से, जो पावर सप्लाई यूनिट होता है उसके थ्रू आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको पीएससी यूनिट से कनेक्ट नहीं करोगे, पावर नहीं दोगे, तब तक ये फायरवॉल आपका ऑन नहीं होगा। तो ये सारे प्रीरिक्विजिट होते हैं। जब आपने इसको पावर दे दिया, इसको आपने रैक में इंस्टॉल कर दिया, तब इसकी बात आती है कि आप हो सकता है कि आप फील्ड इंजीनियर हो, राइट, जिसको हम एफी बोलते हैं शॉर्ट में। फील्ड इंजीनियर दो तरह का काम कर सकता है। ही कैन इंस्टॉल द फायरवॉल और उसको कन्फिग भी कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कि स्किल्ड इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर विद द नेटवर्किंग और सिक्योरिटी स्किल, जिसके पास उसको कॉन्फ़िगर करने की भी मतलब कैपेबिलिटीज है और उसको इंस्टॉल करने की भी कैपेबिलिटीज है। बट कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स नहीं होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स नहीं होती हैं तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ जाएंगे और आपको इंस्टॉल कर देंगे डिवाइस को यहाँ पे। जब यहाँ पे सर वॉइस ब्रेकिंग, डिवाइस इंस्टॉल हो गया, व्हाट नेक्स्ट? तो थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है पीके सर। Just give me 1 minute. Let me. I don't know इस टाइम पे ऐसा क्यों होता है, बट just give me 1 minute. गलती से मेरी रिमोट वाले नेटवर्क से कनेक्टेड था। अभी आ रही है क्या आवाज मेरी आप लोगों को? जी सर, आ तो रही है। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा, बट चलेगा आई गेस। आई थिंक अभी मैंने स्विच कर लिया नेटवर्क को, तो अभी दिक्कत नहीं आना चाहिए कि मैं पहले दूसरे नेटवर्क में कनेक्टेड था, अभी मैं बिल्कुल नजदीक वाले पे कनेक्ट लिया है। सर इट्स क्लियर नाउ। इफ यू अगेन इंटरप्टेड वी विल इन्फॉर्म यू, नॉट एन इशू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक है। सो लेट मी सी। ऑलराइट, सो मैं बता रहा था आप लोग को, ठीक है, मुझे बताना आप लोग को जहाँ डिस्टर्ब होगा। ओके, मैं एक थर्ड नेटवर्क है उस पर स्विच कर लूंगा, जो आई थिंक, या मैं बिल्कुल क्लोज बैठ जाऊंगा राउटर के पास जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता हो। तो एक्चुअली फाइबर है दोनों कनेक्शन, बट फिर भी आई डोंट नो, सम टाइम ऐसा होता है। बट नहीं, सो मैं बात कर रहा था कि जब हमारी बात होती है तो जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट कि आपके पास पावर राउटर के पास होना चाहिए। तब आपके पास क्या होता है कि जब आपने फील्ड इंजीनियर ने इसको सारा इंस्टॉल करके आपको मतलब कनेक्शन कर दिया, केबल वगैरह कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे अब दो तरह का सपोर्ट होता है। एक आपका नॉक सपोर्ट होता है और एक तरह का सॉक सपोर्ट होता है। तो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बोलते हैं। तो अगर ये डिवाइस राउटर होता है, जैसे राउटर या स्विच होता है, तो बेसिकली आपके नॉक के इंजीनियर्स होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। अगर ये डिवाइस आपकी फायरवॉल होती है, फायरवॉल होता है या कोई प्रॉक्सी होता है, किसी तरह का डिवाइस जो सिक्योरिटी मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपका सॉक इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो आपके जो सॉक इंजीनियर्स होते हैं, जैसे आप लोग फायरवॉल पढ़ रहे हो, तो बट नेचुरल है कि आप लोग की जॉब जो लगेगी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में लगेगी, बिकॉज आप आजकल मतलब सॉक के इंजीनियर्स ही फायरवॉल बेसिकली ज्यादा काम करते हैं। ऐसा नहीं, नॉक में भी कुछ आजकल हाइब्रिड कल्चर चलता है जहाँ पे नॉक सॉक का दोनों काम होता है। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओगे, जैसे एचसीएल हुआ, विप्रो हुआ, तो वहाँ पे डेडिकेटेड नॉक होता है, डेडिकेटेड सॉक होता है। तो वहाँ पे फायरवॉल स्किल्ड इंजीनियर वहाँ पे मल्टीपल फायरवॉल पे काम करते हैं। तो वो लोग फिर क्या करेंगे, इस फायरवॉल का रिमोट लेंगे। रिमोट लेंगे, कैसे रिमोट लेंगे? अब उस रिमोट लेने का तरीका क्या है, मैं एक एक करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट दे नीड अ रिमोट। रिमोट लेने के बाद अब इस फायरवॉल की वो स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले सर ड्रॉप सर, बताऊं अभी आप लोग को? वॉइस ड्रॉप सर। I don't know. It's a huge packet loss. Yes, sir. It's ISP, is it not my issue? I was thinking my issue, but it's a huge packet loss. Oh. Let me monitor 1 minute, okay? We'll continue. Yes, sir.
Okay, it looks stable for a while. Sometime latency is going high. So okay, let's continue. So we'll see what is the performance in later stage. So once we have the access of the firewall, means SOC engineer के पास जब access है firewall का, so they start doing the configuration. वो initial configuration के साथ start करेंगे, और they will go to the advanced configuration, they will go to the customized configuration. वो depend करता है कि क्या क्या आपकी कैसे कैसे requirement हो सकता है कि कुछ आप firewall replace करते हो तो बहुत छोटी छोटी configuration की जरूरत हो, आपके पास configuration dumps हो, just आप उसको push कर देना है और पूरी configuration आपका वहां पर replace हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्रॉम जीरो स्क्रैच से आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो फायरवॉल को, जो हम सीखेंगे, राइट। हम दोनों ही तरीका सीखेंगे, कैसे हम किसी एग्जिस्टिंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे फायरवॉल को ब्रांड न्यू फायरवॉल को कैसे हम बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो बिल्कुल हमारे पास ब्रांड न्यू फायरवॉल मिली है तो कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज हम टास्क करेंगे क्योंकि हमने ये समझ लिया कि what is the way of the installing of the firewall on the any branch location, data center location or any remote site location. Now our task is कि किस तरीके से किस तरीके से हम firewall को configure कर सकते हैं, right? ये हमारा task है। तो let's start with the configuration, right? So चलो हम configuration में सीधे जाते हैं and we'll try to complete the initial configuration of the firewalls, right? So इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि फायरवॉल के मॉडल क्या क्या होते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा इनके बारे में, डिटेल के बारे में, फंक्शनलिटी के बारे में। देखो हमारे पास जो फायरवॉल होती है, दो तरह की फायरवॉल होती है। एक हमारी फायरवॉल होती है जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, ये सारे आपके हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हैं, राइट। इसको बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। ये जितने भी आप फायरवॉल देख रहे हो ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। जैसे आपका पहला मॉडल है 220 मॉडल्स, राइट, एक 220 मॉडल आर है। फिर अगर आप धीरे धीरे आप नीचे आओगे तो आपको 820 मॉडल मिलेगा फायरवॉल का, राइट। फिर आप नीचे आओगे तो आपको 3220 फायरवॉल मॉडल मिलेगा आपको। ये सब हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है। ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। फिर अगर नीचे आओगे तो आपको 7050 फायरवॉल सीरीज की मिलेगी, राइट। सो ये भी बहुत आई कैन से लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फायरवॉल इन द पालो अल्टो, जिसकी दो फैमिली है 7080 7050, जो बेसिकली डेटा सेंटर इन्वायरमेंट, जहां पर हमारे डेटा सेंटर की जरूरत होती है वहां पे हम इसको लगाते हैं, राइट। तो दिस इज द पालो अल्टो फायरवॉल। तो इसके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी फायरवॉल कैसे जरूरत होती है। बट लेट्स स्टार्ट। तो मान के चलो कि एक तो ये हो गया आपका फिजिकल फायरवॉल, दूसरा आपके पास फायरवॉल जो होती है वो होती है वर्चुअल फायरवॉल। तो वर्चुअल फायरवॉल क्या होता है कि एक्चुअली वो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन उसको हम किसी फिजिकल सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई सर्वर ले लिया, जो क्लाउड भी होता है वो भी सर्वर के अंदर ही होता है। जैसे मान के आपने सर्वर ले लिया, आपने डेल का सर्वर ले लिया, या मान के चलो कि आपने एचपी का सर्वर ले लिया, किसी टाइप का सर्वर आपने ले लिया। उस सर्वर के अंदर बहुत स्पेस होता है, बहुत रैम होती है, बहुत मेमोरी होती है। तो उसके अंदर आप क्या करो कि एक फायरवॉल की वर्चुअल इमेज आप इसके अंदर इंस्टॉल कर दो। इसको वीएम सीरीज ऑफ द फायरवॉल बोलते हैं। तो आप एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल फायरवॉल को आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि फायरवॉल की कुछ प्रीरिक्विजिट होती है कि उसको मान के चलो कि 2 GB रैम चाहिए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको करेक्ट मत मान लेना, क्योंकि डेटा सेट हर फायरवॉल की अलग होती है। या कुछ उसको सीपीयू चाहिए, कुछ उसको हार्ड ड्राइव चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको जब फायरवॉल इंस्टॉल करोगे तो अपने आप ही, जब इसको वीएम को डालोगे इसके अंदर, जो भी इसका ओवीए फाइल होता है, जो भी इसके अलग अलग तरह के वीएम के फाइल होते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो अपने आप ही उसमें से जगह अपने आप लेकर और मिनिमम जो रिसोर्स होता है फायरवॉल को एलोकेट कर देगा। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप वीएम को इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे, वहीं पे वो फेल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो फिजिकल सर्वर है वो आपका वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए। हाँ जी बताइए सर। इसी में क्वेश्चन है, जैसे कि सॉफ्टवेयर वाला और हार्डवेयर डिफरेंस दो बताए हुए हैं आप। तो हार्डवेयर जो लेते हैं अपन परचेस करेंगे किसी भी चीज का, राउटर हो, स्विच हो, या फिर फायरवॉल हो, कोई भी कंपनी का, तो वो ज्यादा महंगा, हमें कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल कॉस्टली पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में फिर लेते हैं तो अगर सॉफ्टवेयर ही उसमें हमको वो केवल सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा परचेस, अब जो वर्चुअल इमेज मिलती है वो, तो क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब फिर हम सर्वर पे ही इंस्टॉल करके वर्चुअली ही काम कर ले तो फिर हमको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी सर? क्या डिफरेंस? बिल्कुल
बिल्कुल आपकी क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि हम हार्डवेयर क्यों खरीदें, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो हमें सस्ता भी पड़ेगा और हम एक सर्वर खरीद के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आपके पास जैसे क्या होता है कि दो तरह का सोल्यूशन होता है। एक आपका क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन होता है, राइट। सो जो भी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन होता है, सो इस क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन में क्या होता है कि आपका जितने भी राउटर स्विच फायरवॉल होते हैं एक सर्वर के अंदर होते हैं जो बिल्कुल वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन में मतलब सब कुछ आपका एक सेंट्रल लोकेशन पे किसी क्लाउड के अंदर ये सारा कुछ डिप्लॉय किया जाता है। दूसरा सोल्यूशन हम बोलते हैं कि ऑन प्राइम सोल्यूशन, राइट। ऑन प्राइम सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारी डिवाइसेस ऑन प्रेमाइसिस, आपकी जितनी आपकी खुद की लोकेशन है, मतलब आपको क्लाउड नहीं है, आपकी मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेस हैं, राइट, आपके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, तो वहां पे इसको डिप्लॉय करना, चाहे राउटर होगा चाहे स्विच होगा, तो हम चाहें तो इसको एक सर्वर खरीद कर इसको हम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम चाहें तो एक सर्वर खरीद के, लेकिन सर्वर भी कोई लो कॉस्ट का नहीं आता है, अगेन इट्स हाई कॉस्ट। आप इस तरीके से समझो कि अगर आपको सारी डिवाइसेस को सर्वर के अंदर डालना है आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको सर्वर को भी फिर दो एशिया में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्वर के अंदर मान के चलो प्राइमरी राउटर किसके अंदर डाल दिया, प्राइमरी फायरवॉल किसके अंदर डाल दिया, प्राइमरी स्विच किसके अंदर डाल दिया, अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो पूरा आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो आपको एक दूसरा सर्वर भी लेना पड़ेगा जिसके अंदर सेकेंडरी राउटर को डालना पड़ेगा, सेकेंडरी स्विच को डालना पड़ेगा, सेकेंडरी फायरवॉल को डालना पड़ेगा, तो सारी डिवाइस को डालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको एचए में कॉन्फ़िगर करके आप बिल्कुल चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जितनी साइट आपकी होंगी, देखो क्लाउड सॉल्यूशन होता है तो वहां पे तो आपको एक क्लाउड प्रोवाइडर स्पेस दे देता है, आप उसमें सारा कुछ इंस्टॉल कर लेते हो और अपनी क्लाउड टीम के साथ उसको पूरा इंटीग्रेट करते हो, जो कि फ्यूचर सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप सब कुछ सर्वर में करने लगोगे तो आपके नेटवर्क तो बिल्कुल स्मूथ चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ राउटर स्विच आप निक कार्ड भी लगा सकते हो, लैन स्विच सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि आपको फिर एक सर्वर का भी इंजीनियर चाहिए जो पूरे सर्वर को मैनेज करे, आपको नेटवर्क का इंजीनियर भी चाहिए और आपको सिक्योरिटी इंजीनियर भी चाहिए। तो अननेसेसरी आप एक सर्वर के लिए मैनेजमेंट का अपने ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप क्यों ना डायरेक्ट राउटर और स्विच लगा लो यहाँ पे डायरेक्टली फिजिकल, और ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्ट पड़ेगा, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं, क्योंकि जो ब्रांच लोकेशंस होती है ना, इस पे हमेशा आपके जो स्विच राउटर लगते हैं वो लो एंड का लगते हैं, मतलब कि आपका कम पैसे वाले स्विच लगते हैं। लेकिन जहाँ पे डेटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे आपका क्लाउड पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आपको हाई कैपेसिटी का रिसोर्सेज चाहिए जिसमें आप उनकी इमेज डाल के चला सकते हो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस सॉल्यूशन में मेरा ज्यादा फायदा है, राइट, कि आपको कॉस्ट वाइज भी सही रहे, आपको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स आपको डिवाइस मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहे। तो आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं सर्वर खरीद के सारा कुछ डिप्लॉय करके चला लूं, अगर मुझे ये लो कॉस्ट में और मैनेजमेंट भी सही चाहिए तो आप चला लो। अगर लगता है कि नहीं मैं इंडिविजुअल डिवाइस लगाऊं तो भी लगा सकते हो। बट द बेस्ट रिकमेंडेशन इन द इंडस्ट्री कि ऑलवेज जो ब्रांच लोकेशन हमारा खुद ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क होता है, लोग सर्वर नहीं यूज करते हैं, दे गो फॉर द इंडिविजुअल डिवाइसेस, वहां पे जाकर नॉर्मल राउटर स्विच और फायरवॉल लगाते हैं। ठीक है सत्यम? यस सर, राइट सर, ठीक है सर। राइट, सो लेट्स गो इन द लैब। सो वंस वी स्टार्ट द सेशन, मतलब ऑलरेडी हमारे सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जो आप लोग को एक दो दिन के अंदर आप लोग को इस रैक की एक्सेस मिल जाएगा। इसको आप लोग करना क्या, आपको सिर्फ अपने इंटरनेट से जैसे करके दिखाता हूँ। जैसे एक रैक है, तो इसको मैंने खोला, तो यहाँ पे जैसे जैसे खोलोगे तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आपको इसको बस लॉगिन करना है। तो जैसे मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, आप लोग के नेम से लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से आप लैब लॉगिन करोगे, जैसे लॉगिन करोगे लैब को, तो इस तरीके से आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग, जैसे देखो अभी कुछ कुछ लोगों का यहाँ पे नेम दिख रहा है जो प्रीवियस बैच के हैं, अपने फोल्डर बना के अपने लैब कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो इसमें फोल्डर बनाकर, या कोई डिजाइन मेरी लैब्स हैं इसके अंदर पड़ी हुई हैं, आप इन सारी लैब्स को एक्सेस करके, जो मैं कराऊंगा पूरे थ्रू आउट द सेशन में, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो इन सारी चीजों को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, इसके लिए कुछ भी मतलब हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल पे चल तो जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपके लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे या मैक पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, राइट, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद द फायरवॉल्स। ठीक है, सो अभी जैसे मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ एंड मैं दूसरे पोर्ट पे हूँ। हाँ जी बताइए, पूछिए।
हाँ सर, जो आपने बताया, आप जो लिंक शेयर करेंगे, ये भी एक एग्जांपल ही है जो लास्ट आपने बताया है कि हमें कुछ भी इमेज खरीदने करनी पड़ेगी पाल्टो लेके, राउटर स्विच या हाई रैम वाला ज्यादा नहीं लेके सादा लैपटॉप में भी कोई यूज कर सकते हैं। हाँ राइट। सो ये अभी क्या है कि इसको आपको अपने लैपटॉप पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं। ये सारी फायरवॉल जो है मेरे सर्वर पे, मतलब कि GuiNet के सर्वर पे सारी फायरवॉल्स ही होस्टेड है, राइट। सो GuiNet के सर्वर पे सारी फायरवॉल इमेज रन कर रही हैं। सो एक तरह से पूरा सब कुछ वहाँ पे सिमुलेशन चल रहा है और आप लोग इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। आपके लैपटॉप पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन चले गए और आप लोगों को बिल्कुल वही फील आएगा जो आप अपने रियल नेटवर्क में करते हो। जी सर। तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं एक लैब बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। सो मैं इसको डिलीट ही करता हूँ, मान के चलो कि, या मैं एक यहाँ से न्यू लैब बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो डे 0 जून बैच लैब, ठीक है। सो ये हमारी पहली लैब है जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है, राइट। सो मुझे करना क्या है, बिल्कुल जीरो से हम जब बात कर रहे हैं तो व्हाट आई नीड। सो मान के चलो कि कंपनी ने आपको एक पालो अल्टो फायरवॉल दे दिया। सो मेरे पास एक फायरवॉल चाहिए, तो मैं यहाँ से पालो अल्टो फायरवॉल यहाँ से ले लेता हूँ। तो मान के चलो कि मैंने फायरवॉल ले लिया, इसमें से ये ले लेता हूँ, ठीक है, 5010 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसे स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं जस्ट सिंपली क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दूंगा, स्टार्ट बटन पे। तो ये स्टार्ट हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब फायरवॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें होती है। ये फायरवॉल आपको मिल गए। ये फायरवॉल मिलने के बाद अब आपके इसके साथ कैसे बात करोगे। तो फायरवॉल से बात करने के लिए, कोई भी नेटवर्क डिवाइस से बात करने के लिए दो तरीका होता है, राइट। किसी भी डिवाइस से आप बात करने के लिए आपको दो तरीका होता है। या तो उसको CLI से आप बात कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, या इसको आप GUI से बात कर सकते हो, राइट, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यही दो तरीका होता है, किसी भी डिवाइस से आप बात कर सकते हो, चाहे वो राउटर हो या स्विच हो या फायरवॉल हो या SD-WAN की डिवाइसेस हो, कुछ भी हो। सो GUI या CLI, तो CLI एक ना बेसिकली ट्रेडिशनल तरीका था जो पहले के जमाने में, या आज भी हम कुछ कुछ करते हैं और अभी भी करेंगे, ऐसा नहीं खत्म हो गया, बट इट्स लाइक मोर पॉपुलर इन द पास्ट। बट नाउ GUI इज मोर पॉपुलर, राइट। सो GUI जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इट्स मोर पॉपुलर देन द CLI। आजकल जितनी भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग की बात करते हैं, राइट, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग की जब बात करते हो आप, सो उसके अंदर आपका आता है बेसिकली, आप जब SD-WAN की बात करते हो, SDN टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आप SD एक्सेस की बात करते हो, आप ACI की बात करते हो, राइट। आप किसी भी SDN सॉल्यूशन की बात करते हो, तो इस सब में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है GUI का होता है। आप जब फायरवॉल की बात करते हो, किसी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करते हो, सब पे GUI आपका चाहिए होगा। किसी भी आप SASE सॉल्यूशन की बात करते हो तो इस पे भी आपको GUI चाहिए, कुछ भी CLI नहीं चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो द फ्यूचर इज GUI, राइट, CLI इज नॉट फ्यूचर। बट बात करने का तरीका दो ही हमारे पास है, या तो CLI हो सकता है या तो GUI हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे इस पालो अल्टो फायरवॉल से बात करना है, राइट। तो मैं या तो CLI से बात कर सकता हूँ या GUI से बात करता हूँ। CLI से बात करना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा। CLI से बात करने के लिए मुझे, आप लोगों को सबको पता होगा कि हम उसको बोलते हैं कंसोल केबल या कंसोल कनेक्शन, राइट। कंसोल कनेक्शन से ही हम CLI से बात कर सकते हैं ना, राइट। कि आप जाते हो फायरवॉल पे या किसी राउटर पे, किसी स्विच पे, वहां पे कंसोल केबल लगाते हो, देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू द राउटर। आप लोगों ने किया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद होगा। ऐसा कोई हो कि मुझे कंसोल नहीं पता तो जब बताओ मुझे, बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आई एज्यूम कि कंसोल सबको पता होगा। दूसरा तरीका होता है, जब आप कंसोल से कर लिया, दूसरा तरीका होता है कि आप GUI से कैसे बात करते हो। GUI से बात करने का दो तरीका होता है, या तो HTTP करोगे इसको, या इसको HTTPS करोगे। ये दोनों, HTTP पोर्ट 80 पे काम करता है, HTTPS पोर्ट 443 पे काम करता है। तो ये ब्राउजर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, मतलब आप इसको ब्राउजर से एक्सेस करोगे, राइट। सो आप ब्राउजर से एक्सेस करोगे, मतलब जैसे मैं इसको देखो, अभी ये जो मैंने एक्सेस किया यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये बेस्ड ऑन द HTTPS है, ठीक है। तो इस तरह से GUI एक्सेस लेने के लिए आपको जाकर, आपको जैसे एक facebook.com खोलते हो, yahoo.com खोलते हो, या कोई भी वेबसाइट खोलते हो, उन सब पे जाकर आप टाइप करते हो, वहां से जाकर आपका एक्सेस मिल जाता है। सिमिलर तरीके फायरवॉल को भी करना है,
ठीक है, दोनों तरीका हम सीखेंगे अभी, कैसे कंसोल का और कैसे हम जीयूआई की बात करते हैं। तो जब भी आपको कंसोल लेना होगा तो भी आपको पीसी चाहिए होगा, मतलब सीएलआई से भी लेना होगा तो भी एक पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए होगा। अगर आपको जीवाई से लेना है तो भी आपको एक पीसी लैपटॉप चाहिए होगा। तो हमारे केस में भी एक पीसी और लैपटॉप चाहिए इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। ऐसे तो एक्सेस हो नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक पीसी चाहिए, तो मैं अपने गया नोड के अंदर और मैं यहाँ पे एक पीसी लिया जो मेरे पास है विंडो यहाँ पे, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा आइकन बना देता हूँ अच्छा सा, और विंडोज 7 की एक पीसी है। मैं इसको लेकर इसको भी मैं ऑन कर सकता हूँ यहाँ से। अब बात आती है कि इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, इन दोनों डिवाइसेस को मुझे कनेक्ट करना है। हाउ कैन आई कनेक्ट इट? सो कनेक्ट करने के लिए अब थोड़ा सा मुझे ना कुछ आप लोगों को बताना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा कि फायरवॉल आपको दिखती कैसी है। पहले इसको देखो, ये तो आपको वर्चुअल इमेज दिख रही है, बट एक्चुअल आपको फिजिकली फायरवॉल दिखती क्या है, कैसी है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोग को ले चलता हूँ, फिर से वर्चुअलाइज कराता हूँ, मतलब वर्चुअल दुनिया में ले चलता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कराता हूँ। सो यहाँ पे जाके आप लिखो पालो आल्टो फायरवॉल, ठीक है। तो देखो पालो आल्टो फायरवॉल मैंने लिखा तो बहुत सारी इमेजेस मुझे यहाँ मिल गई, राइट। एंड वी कैन सी कि इन सारी इमेजेस में हमारे पास ये सारी इमेज है पालो आल्टो फायरवॉल। तो मैं किसी एक को खोल लेता हूँ, जैसे मान के चलो कि सबसे स्मॉल फायरवॉल हमारे पास PA220 है, तो मैं इसी को खोल लिया। तो जब आप फिजिकली किसी फायरवॉल को देखोगे ना, या मान के चलो मैं वर्चुअली भी किसी फायरवॉल को देखूंगा, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर पहले बैठ जाना चाहिए कि फायरवॉल दिखती कैसे है। जब तक आपके दिमाग में कोई पिक्चर विजुअलाइजेशन नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा आपके लिए समझने में ना डिफिकल्टी आती है। जिस चीज को आप विजुअलाइज करते हो तो उसको समझना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। तो मान के चलो कि आपको फायरवॉल दे दिया जाए, मैं आपके घर पे फायरवॉल भेज दिया कोरियर से, और मैंने बोला कि भाई आप इसको ना कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर करके मुझे इसको बताओ, इससे मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी डाल दो, या किसी इंटरफेस पे इस पे कॉन्फ़िगर करके पीसी कनेक्ट कर दो। तो पहले तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि जो फायरवॉल के जो टॉप पे यहाँ पे इंटरफेस दिख रहे हैं, राइट, जो भी इंटरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है। एक एक आपको मतलब समझना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ थोड़ा और बड़ा होता है क्या इमेज ये। सर हाँ एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। एक बार स्विच आई थी और राउटर था, तो दोनों में पोर्ट कम था। राउटर में भी पोर्ट कम होता है, स्विच में भी उसमें पोर्ट कम था। तो मुझे पता नहीं, मतलब आइडिया नहीं लगा कि वो स्विच है या राउटर है, इस टाइप से। ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो ये सारी चीजें आपको चैलेंजेस मिलते हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि स्विच और राउटर और फायरवॉल को हम कैसे पहचाने। तो वही मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो मान के चलिए कि हमारे पास है, मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ, पोलो अल्टो के ही साइट पे खोल लेता हूँ, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा भी इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सही दिखेगा ये। हाँ, तो देखिए, तो ये मान के चलिए कि पालो आल्टो फायरवॉल है। तो पहले एक एक करके इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पालो आल्टो फायरवॉल कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्स वो पोर्ट्स हैं बेसिकली जिसके अंदर ये इतने पोर्ट में जो इधर के दिखा रहा हूँ, मान के चलिए कि 8 पोर्ट यहाँ दिखा रहे हैं। ये हो सकते हैं कि 8 की जगह 24 भी हो किसी फायरवॉल में। अगर आप हाई एंड फायरवॉल लेते हो तो ये ज्यादा पोर्ट हो सकते हैं, 46 हो सकते हैं, 96 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके कितनी रैक यूनिट की फायरवॉल है, क्या मॉडल है, उसी हिसाब से आपको पोर्ट्स वहां पे मिल जाते हैं। तो ये जो पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सारे पोर्ट्स बेसिकली ये वो पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स के अंदर आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, इन पोर्ट्स के अंदर आप दो तरह के कनेक्शन कर सकते हो। या तो इसके अंदर आप वैन कनेक्शन कर सकते हो, वैन मींस के आप आईएसपी से कनेक्शन पे टर्मिनेट कर सकते हो, या इन सारे पोर्ट्स पे आप लैन कनेक्शन कर सकते हो, राइट। इन दोनों तरह के ही कनेक्शन आप कर सकते हो। या इस पोर्ट के थ्रू आप तीसरा कनेक्शन जो होता है वो आप फायरवॉल टू फायरवॉल कनेक्शन कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एचए कनेक्शन बोलते हैं, हाई एबिलिटी कनेक्शन बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली 3 तरीके का हम कनेक्शन कर सकते हैं। लैन का मतलब किसी स्विच से कनेक्ट करना है, किसी राउटर से, वैन का मतलब किसी राउटर से कनेक्ट करना है, एचए का मतलब कि दो फायरवॉल को आपस में क्लब करना है, मतलब उनको प्राइमरी सेकेंडरी बनाना है। तो वो सारी चीजें हम इन सारे पोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे पोर्ट्स को हम अपने पर्पस के हिसाब से लैन वैन और एचए के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका लैन में कनेक्शन होता है, कैसे आपका वैन में कनेक्शन होता है, कैसे एचए में होता है, क्योंकि ये सारा हमारा मॉड्यूल है।
तो एक एक करके हम इंटरफेसेस करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द जर्नी में दिखाऊंगा। अब इन सारे पोर्टों के बारे में तो सीख लिया आपने। अब बात आती है कि हमारे पास कुछ ये पोर्ट हैं जिसको हम एक बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। ये फिक्स रहेगा, आप फायरवॉल खरीदोगे तो, या आप वीएम भी लोगे तो भी ये पोर्ट आपको फिक्स मिलेगा। आपको आप ऐसा नहीं कि पोर्ट नहीं मिलेगा, वर्चुअल में मिलेगा और आपको ये फिजिकल में मिलेगा, मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, दूसरा पोर्ट आपको फिजिकल में मिलेगा, ठीक है, वर्चुअल फायरवॉल में नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें अपने आप कंसोल आ जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे आता है। वो कंसोल पोर्ट होता है, ताकि अगर आपको CLI लेना है तो आप लैपटॉप लगाओ। हाँ जी, कोई कोई पूछ रहे हैं? पंकज सर, सौरभ, मैं बोल रहा था कि बताइए। हाँ, ये जो एंट्री लेवल जो ये बड़ा एंट्री मॉडल जो है, इसमें अलग से नीचे वाला पोर्ट नहीं रहता, लेकिन ये हायर मॉडल में नीचे वाला पोर्ट रहता है ना अलग से। क्वेश्चन तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप फिजिकल फायरवॉल खरीदते हो तो ये तो बेसिक मॉडल है। कुछ आपके फायरवॉल्स आते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला था कि जब HA हम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इनबिल्ड HA पोर्ट्स आते हैं। उसमें एक पोर्ट रहता है, HCI पोर्ट्स को बोलते हैं, हाई स्पीड कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंटरफेस बोलते हैं उसको, HSCI पोर्ट बोलते हैं। वो इनबिल्ड रहता है, ठीक है, तो उस पोर्ट को आप यूज कर सकते हो। बाकी आप इसमें से भी एक पोर्ट लेकर उससे कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसमें HA1, HA2, HA3 तीन तक के पोर्ट चाहिए होते हैं। तो HCI एक ही पोर्ट रहता है, बाकी दो पोर्ट चाहिए तो आप नॉर्मल इंटरफेस यूज करके उसको कर सकते हो, जो हम HA में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बट यस, डेफिनेटली अगर फिजिकल फायरवॉल लेते हो तो आपको डेडिकेटेड HA पोर्ट मिलता है। वर्चुअल फायरवॉल में आपको HA पोर्ट डेडिकेटेड नहीं मिलता है। वी कैन यूज ओनली द इंटरफेसेस। इसी को हम HA में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब बात आती है कि हमारी जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, राइट, व्हाट इज द मैनेजमेंट इंटरफेस, व्हाट इज द कंसोल। तो कंसोल इंटरफेस का मतलब कि अगर आपको पालो अल्टो फायरवॉल का CLI एक्सेस लेना है थ्रू अपने PC और लैपटॉप, जो भी बस डिवाइस है, राइट, सो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप एक पैकेट हो गया अभी सर अभी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है सर। सर वो वहाँ पे लेटेंसी ज्यादा, हाई हो गया था सर। लेटेंसी हाई हो गया। ये ISP ना आज हमारी लाइव क्लास में सारा पंगा कर रहा है। सर एक और चीज इसमें लेटेंसी के बारे में बात करना है। ये जो सर OLT से जब फाइबर हम लोग अपने घर में लेते हैं तो वो OLT से आती है, तो OLT से जब पावर निकलती है तो क्या गर्मी के कारण क्या हीट जब होती है गर्मी ज्यादा, तो उसमें क्या उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है क्या फाइबर के ऊपर कुछ टाइप से? क्योंकि मैंने भी BSNL यूज किया था तो BSNL वाले समथिंग बोल रहे थे कि गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ा लेटेंसी आएगी आपके फाइबर में, मतलब लॉस आएगी, ऐसा बोल रहे थे। हम बोले वो तो जो डिवाइसेस होती हैं वो तो AC में रहती है, वहां से लेजर बीम्स निकलती हैं, तब उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? तो बोले नहीं होती है थोड़ी, तो ऐसा कुछ बोल रहा हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक इतनी गर्मी भी नहीं है इस बार हमारे पास, बट फिर भी सर वो वाला है कि पेट इशू खराब होता है करने का वाइफ वाला। सर, ये इशू होता है क्योंकि ये जो घर में जो डिवाइस लगा रहता है ना सर, ये राउटर वगैरह, वो हीट के कारण उसमें सर ये उसका जो मतलब परफॉर्मेंस है वो डेटोरेट कर जाता है। तो उसके वजह से कभी लेटेंसी हाई होता है, कभी कभी ये परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। ये हमारे घर में जो लगा हुआ है उसके कारण होता है सर, वो OLT से नहीं होता, क्योंकि OLT तो वहाँ पे ठंड में रहता है। हमारे घर का जो डिवाइस होता है उसके लिए होता है। अभी आप देखिएगा, आप जो फेस किए है कि गर्मी के कारण होता है, अभी देखिएगा बारिश के टाइम में ये ठीक हो जाएगा। जी फोन वो जो डिवाइस राउटर लगी होती है, और ये आपका ठंडी के टाइम में भी देखिएगा वो सही चलेगा, लेकिन ये थोड़ा गर्म हो सर जाता अभी आप किस ISP का कनेक्शन यूज कर रहे हैं? एयरटेल का है। ऐसा दिक्कत नहीं आती है, मतलब कभी दिक्कत नहीं आती है नहीं, कौन सी वारंटी लगा रखी है उन्होंने, कुछ आइडिया है आपको? इसमें आई थिंक एयरटेल का कुछ लगा है, वारंटी लगा रखा है। नहीं, पता नहीं मैं कंपनी का नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो उनसे कंप्लेन करा के ना सर जेटी वगैरह की लगवा लीजिए। ये चाइनीज वारंटी होगी, इनमें ज्यादा आती है लेटेंसी। अच्छा। उनसे बोलिएगा जेटी या नोकिया की वारंटी लगाओ, मेरा जो है वैसा काम है ऑनलाइन ज्यादा, तो वो आपको देंगे सर मैं प्रेफर करके। डुअल कनेक्शन लगा रखा है, बट एक सेकेंड में अभी आवाज आ रही है ना, कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? हाँ आ रही है। कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा किसका कनेक्शन है सर? दोनों ही एयरटेल के ही हैं, दोनों एयरटेल है। एक तो लीज लाइन है, एक तो एक्चुअली वो लीज लाइन थोड़ा दूर पड़ रहा है मेरे से ना, वहां से रेंज, पहले उसी पे मैं सारा काम कर रहा था, बट थोड़ा सा रेंज का दिक्कत आ रहा है तो मैं उसको शिफ्ट करा रहा हूँ कहीं और, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस 10 दिन की और प्रॉब्लम है। तो एक जो वहाँ बैठा हूँ ये ब्रॉडबैंड है, दोनों ही एयरटेल के हैं,
सर एक दूसरा तो लेना चाहिए, एक अगर एक एयरटेल है तो एक दूसरा पक्का होना चाहिए। अरे मैंने लगवाया था, एक दूसरा ही लगाया था, एक साइडल का लगा था। एक्चुअली क्या था, उनका और प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने उनको बंद नहीं करा नहीं दिया। सर, या तो आप एयरटेल का लेना या जियो का लेना, क्योंकि छोटी हाँ। एएसपी ना रूट इन पे ही होती है आगे जाके, एयरटेल हम्म। या जियो पे ही होती है। चलिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक और लगवा ठीक है लेते हैं, ठीक कोई दिक्कत। सॉरी थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हुआ, बट चलो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास कंसोल केबल की बात होती है तो हम पीसी या लैपटॉप से उसे कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एंड उससे हम उसका कंसोल केबल ले लेंगे, दैट इज सीएलआई बेस, ठीक है। तो सीएलआई बेस कंसोल कनेक्शन हमारे यहाँ पे हो गया। तो अगर सीएलआई चाहिए तो हमेशा आपको कंसोल के थ्रू लेना पड़ेगा। बट अगर आपको सेम चीज, मतलब इसी फायरवॉल का अगर जीओआई चाहिए होगा एक्सेस, तो फिर से आपको पीसी या लैपटॉप चाहिए होगा, राइट। अगेन यू नीड अ लैपटॉप और पीसी, कुछ भी आपको चाहिए होगा। बट आपको इस केस में आपका जो कनेक्शन होगा RJ45 जो केबल होगा, दैट नीड टू बी टर्मिनेटेड ऑन योर मैनेजमेंट इंटरफेस पोर्ट। और यहाँ पे आपका जो भी कंसोल की बात होता है, इसमें सीरियल केबल की जरूरत होती है, राइट। आप लोगों को सब पता होगा कि इसमें सीरियल केबल होता है, जिसके अंदर हम कनेक्टर यूज करते हैं, यूएसबी टू जो RJ45 टू यूएसबी केबल होते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं हम, या फिर हमारा RJ45 टू RJ45 भी कनेक्शन आते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक द सीरियल कनेक्शन। ये दो तरीके से चीजें हम इसको कंसोल केबल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीओआई चाहिए, जब भी आपको जीओआई एक्सेस चाहिए, तो आपको हमेशा RJ45 केबल जो कैट 5 कैट 6 केबल्स आती हैं, यू जस्ट हैव टू टर्मिनेट ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस, और एक साइड आपको अपने लैपटॉप पे उसके जो लैपटॉप के पोर्ट निक कार्ड होता है उस पे लगाना पड़ेगा, देन यू कैन टेक एन एक्सेस। बट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, जब भी आप फायरवॉल खरीदते हो तो आप जीओआई एक्सेस कैसे लोगे? सीएलआई एक्सेस लेने के लिए तो आपको सिंपली सीरियल केबल लगाया और कॉम पोर्ट आपने सेट किया, और आपको यहाँ पे सीरियल केबल के थ्रू, मतलब पट्टी सेशन पे गए और आपको यहाँ पे एक्सेस मिल गया, राइट। आप यही करते हो ना, जैसे आप पट्टी सेशन खोलते हो, आप लगाते हो, और वहां पे जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पे आप सॉरी सीरियल पे जाते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप कॉम पोर्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और जैसे ही आप केबल लगाते हो अपने आप ही यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है, ओपन करोगे आप अपने आप ही एक्सेस मिल जाएगा। तो ये हो गया सीएलआई। लेकिन जीओआई में क्या करोगे आप? तो जीओआई में क्या करना है, जीओआई के लिए तो आईपी चाहिए होगा। आप ब्राउजर में जाकर किसी को भी आईपी से यूज करोगे ना आप, तो आपको आईपी चाहिए होगा, तो आईपी कहाँ से मिलेगा? सर वो एक तो डिफॉल्ट आपको, आता है। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। तो एक तो आपको लैपटॉप पे आईपी चाहिए, यू नीड आईपी ऑन द लैपटॉप। दूसरे साइड आपको एक फायरवॉल पे आईपी चाहिए। दोनों पे अगर आईपी नहीं होगा तो हाउ यू कैन टॉक टू ईच अदर? तो करना क्या पड़ेगा कि ये जो फायरवॉल आती है, इसके साथ कोई भी मैन्युफैक्चर फायरवॉल होती है, तो बाय डिफॉल्ट एक मैनेजमेंट इंटरफेस पे एक आईपी हार्ड कोडेड होती है, जिसको बोलते हैं 196.168.1.1। ये आईपी इस पे हार्ड कोडेड होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप फॉलो टू फायरवॉल खरीदोगे तो ये आईपी आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। जब आईपी आपको यहाँ मिलेगा तो आपको ये पता है कि यहाँ पे एक आईपी पड़ी हुई है, तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे केबल लगा दो सिंपल पीसी टू आपके पास फायरवॉल के बीच में RJ45, और अपने साइड पे आप सेम सीरीज का आईपी दे दो। मान के चलो कि आप 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जाकर आप दे दो 192.168.1.2 दे दो, /24 सबनेट दे दो। मान के चलो किसी सबनेट /24 का ही बाय डिफॉल्ट रहता है इसमें, तो आपने /24 का दे दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आपने 2 दिया, यहाँ पे 1 दिया, अपने केबल लगा दिया, इनके बीच में कनेक्शन हो गया, और आप यहाँ से पिंग करोगे तो आपका फायरवॉल पिंग होने लगेगा, क्योंकि मैनेजमेंट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट उसमें पिंग अलाउ होता है। तो आप इसको पिंग करने लगोगे। आप पिंग करने लगोगे तो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस पे डिफॉल्ट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट इस पे पिंग भी अलाउ होता है, और इस पे आपका HTTPS भी अलाउ होता है बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब फायरवॉल मैन्युफैक्चर होती है तो इसको अपने आप ही वहां से अलाउ करके भेजा जाता है। तो जैसे ही आप पिंग कर लिए पीसी से, पिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ब्राउजर में जाना है, और ब्राउजर में जाकर इस फाइल को एक्सेस करना है वाया द HTTPS। तो वो कैसे होता है मैं भी करके दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे पोर्ट्स होता है कंसोल के लिए। अगर सी टाइप कनेक्टर से आपको कंसोल लेना है तो भी आप, सी टाइप केबल से बेसिकली लेना है तो भी आप ले सकते हो। ये भी कंसोल लेने के लिए सी टाइप का कनेक्शन एक है। अगर आपको कोई यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, आईओएस इमेज अपग्रेड करना है, कुछ लाइसेंसिंग की फाइल अपलोड करनी है, तो आप यूएसबी से भी कर सकते हो, राइट। ये भी आपके पास प्रोविजन है। और ये सारे जो एलईडी हैं, ये सारे एलईडी हैं, ये आपके फायरवॉल के स्टेट्स के बारे में बताती हैं, कि मतलब कि ये या तो ग्रीन होंगी, या तो एम्बर होंगी, या तो रेड होंगी। अगर सब कुछ ग्रीन है तो मान के चलो कि आपके फायरवॉल में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, मतलब आपका टेम्परेचर ओके है, आपका कोई अलार्म नहीं है, आपके स्टेट्स भी ओके हैं, आपके एसी की भी कंडीशन ओके हैं।
पावर भी ओके है। लेकिन अगर ये एम्बर है तो समथिंग कुछ माइनर इशू है, कुछ मेजर कंसर्न नहीं है, बट माइनर इशू है, यू जस्ट हैव टू चेक कि कुछ आपके पास दिक्कत आ रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हो एज ए प्रीरिक्विजिट कि आपके पास कुछ अलर्ट आ रहे हैं, एम्बर मतलब कुछ वार्निंग है आपके लिए। बट अगर कुछ रेड है तो समझो कि इज समथिंग वेंट रॉन्ग इन योर डिवाइस, तो आप उसको फटाफट आपको इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ेगा। रेड का मतलब कि खतरा है यहाँ पे, मतलब कि या तो सब कुछ गड़बड़ है, या तो एच अप डाउन हो गया, या तो स्टेट्स डाउन हो गई, या तो अलार्म कुछ क्रिटिकल आ गया आपके पास, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। 3 कलर है, ग्रीन, एम्बर और रेड। सो ग्रीन इज एवरीथिंग इज फाइन, एम्बर इज लिटिल बिट इशू वार्निंग, बट अगर रेड है तो सब कुछ वहां पे डेंजर है, यू जस्ट हैव टू टेक द इमीडिएट एन एक्शन, राइट। तो ये आपके बेसिकली हर एक फायरवॉल, जितने भी फायरवॉल आप लोगे इसके अंदर ये सारे कुछ बेसिक चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। और बीइंग अ सिक्योरिटी इंजीनियर और पालो आल्टो फायरवॉल इंजीनियर, यू शुड नो दीज थिंग्स। और आपको फिगर जो है आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ऑलवेज इन योर माइंड कि भाई पालो आल्टो फायरवॉल बेसिकली दिखती कैसी है। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, हाउ कैन यू गोइंग टू ट्रबल शूट, कैसे आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अगर मान के चलो कि आप सॉक में बैठे हो और आपके पास एफी गया फायरवॉल लगाने के लिए, और सॉक में आप बैठे हो और यू आर द L2 और L3 इंजीनियर, मान के चलो आप L3 इंजीनियर हो, आपको एक फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन कराना है। आप वहां पे जो आपको आपके पास जो आपका जो एफई इंजीनियर गया, एफई मतलब फील्ड इंजीनियर जो गया साइट पे, आप तो जाओगे नहीं, कंपनी इतना खर्चा करती नहीं, तो लोकल वहां से लोकल इंजीनियर को भेजती है। अब वो बोलता है कि जी मैं साइड पे आ गया, मैंने इसमें पावर दे दिया, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो आपके दिमाग में बताना पड़ेगा कि भाई तुम ना फायरवॉल पे ना मैनेजमेंट इंटरफेस पे केबल लगाओ अपने लैपटॉप से, और यहाँ पे आईपी पहले से पड़ी होगी, तुम अपने लैपटॉप पे आईपी डालो, पिंग करके देखो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस पे आईपी डालो मैनेजमेंट की जो मैं बता रहा हूँ वो, ताकि मैं रिमोटली उसको एक्सेस कर पाऊँ। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पोर्ट कैसे दिख रहे होंगे। आप ये भी पूछोगे, अगर वो बोलता है कि जी पावर नहीं आ रहा, तो आप बताओ कि एलईडी स्टेटस बताओ, क्यों नहीं आ रहा पावर, क्या है, ये जल रही है कि नहीं जल रही है, इसमें ग्रीन है, एम्बर है, रेड है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यू कैन जस्ट टेल इजीली। अगर बोलता है कि मुझे कुछ फाइल कॉपी करना है, तो बोलोगे कि ठीक है, आप वहां देखो कोई यूएसबी पोर्ट होगा, आप वहां पे अपनी यूएसबी ड्राइव लगा दो और कॉपी कर लो। तो इस तरीके से उसको आप एडवाइस कर सकते हो। तो एडवाइस करने से पहले आपके पास खुद की नॉलेज बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर एक बार मैं वोल्वो में फोर्टीनेट का इतना ही छोटा सा ही वो फायरवॉल था, लेके गया था वो, मतलब मुंबई से उन्होंने प्लान डाला था, तो मुझे लोकली हायर किए, तो मतलब भेजे थे उन्होंने वोल्वो के लिए। तो ये उन्होंने तीसरे या मतलब जो स्विच पोर्ट टाइप का दिख रहा है ना 8, इसमें से उन्होंने किसी एक पे 3 नंबर पे लगवाया था, मतलब 3 नंबर पे, और उसका एक्सेस लिए थे। मैं कंसोल लेके गया था अपने साथ, लेकिन वो बोले रिकमेंडेशन नहीं है, उस डब्बे के साथ ही लैन केबल आई थी, तो वो 3 नंबर पोर्ट पे ही लगा करके फोर्टीनेट का था। आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। हाँ फिर, हाँ तो बताइए सत्य, आगे 14 का था आगे, उसके बाद मेरे को आवाज नहीं है आपकी। हाँ सर, फोर्टीनेट, फिर वो किसी भी ये जो स्विच पोर्ट है ना सर, जितने भी दिए हैं 8, इसी में से उन्होंने किसी एक पर लगवाया था, और वो एक्सेस मिल गया था उनको। मतलब मैं रिमोटली था, एनी डेस्क पे भी था, थे वो पिंग कर लिए थे। वो मैनेजमेंट का शायद यूज नहीं किए थे मेरे ख्याल से। तो ऐसा भी होता है क्या सर? हाँ डिपेंड करता है ना, कि अगर मान लो फाइलो की जो इंटरफेस की आईपी है ऑलरेडी रीचेबल है राउटिंग के थ्रू, तो आपको पिंग कर लेंगे, आपको बोल देंगे कि आईपी दे दो इस पे, और आपको पिंग कर लेंगे वो, नो 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 सिंपल सा। नो नो सर, न्यू हाँ। न्यू न्यू फॉर मैं ही उसको फोर्टीनेट को ओपन किया था, डब्बे से अच्छा निकाला 14 हो गया था। था। एक बार हाँ मुझे 14 का चेक करना पड़ेगा कि कैसे उसका मैनेजमेंट लेते हैं, कि मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन में बहुत पहले किया था, तो लेटेस्ट में देखना पड़ेगा। बट पालो आल्टो तो आई एम श्योर कि मैनेजमेंट के थ्रू आप ही ले सकते हो, उसका कोई दूसरा पोर्ट नहीं है, ठीक है। सर छोटे डब्बे होते हैं ना, 330 है, 40 है, 50 है, उसमें आप कहीं पे भी पोर्ट पे लगा के आप ले सकते हो। अच्छा, हाँ वही किसी पोर्ट पे सर। लगा ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब है ना आपका स्विच पोर्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए आप कोई भी पोर्ट पे लगा के आपको ऑटोमेटिक डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिल जाता है 192.168 अच्छा 1.99 अच्छा, आप सब एक्सेस कर समझ सकते गया, हो। हाँ ठीक है ठीक है, जीरो टच प्रोविजनिंग वाला हिसाब किताब, ठीक है समझ गया, ओके ओके, यस यस गॉट इट यस गॉट सर, इट तो वो गॉट बड़े इट। डब्बे जो होते हैं ना उसमें सिर्फ मैनेजमेंट पोर्ट आता है, हाँ स्मॉल डब्बे में हाँ मैनेजमेंट पोर्ट वही सर, वही मेरे मैं को थोड़ा डाउट था ना सर, इसीलिए मैं पूछा मैं। राइट 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 राइट, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू, आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आप लोग एक्चुअल फायरवॉल पे चलता हूँ फिर से, एंड लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने एक फायरवॉल लगा लिया, एक मैंने पीसी लगा लिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इस फायरवॉल और इस पीसी पे, विकास अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे लिख रहा है आप लिख रहे हैं वहां से, तो
तो बेसिकली होगा क्या कि जब भी आप इस फायरवॉल पे जाओगे तो ये पीसी आपके पास है, तो इसके लिए आपको अगर जीयूआई एक्सेस लेना है, राइट, सो आपको बेसिकली करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द फायरवॉल विथ योर पीसी। तो एक तरफ फायरवॉल के इंटरफेसेस हैं, एक तरफ आपके पीसी के इंटरफेसेस हैं। तो फायरवॉल में आपको चूज करना हमेशा मैनेजमेंट इंटरफेस, आपको हमेशा मैनेजमेंट इंटरफेस चूज करना है, क्योंकि आप जीयूआई एक्सेस लेने की बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम वर्चुअली हैं तो हम इसमें कंसोल केबल नहीं लगा सकते हैं, नो प्रोविजन वी हैव कि हम कंसोल केबल कनेक्ट करें, बट हम इसका मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू जीयूआई एक्सेस ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया, यहाँ कनेक्ट किया, और यहाँ पे आपका ईथरनेट पोर्ट हुआ जो पीसी का पोर्ट हुआ। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फायरवॉल यहाँ पे खुल जाए, मतलब आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेम चीज, मैनेजमेंट इंटरफेस और आपका पीसी का, यही चीज मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे एक आपको मैनेजमेंट इंटरफेस से पीसी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज हमने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले अब ये फायरवॉल आपकी है तो मुझे इसकी कंसोल की जरूरत पड़ेगी आपको। तो अगर आप लैब में हो तो कंसोल कैसे लोगे, तो आप इस पर सिंपल डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो इस फायरवॉल की कंसोल आपको मिल जाएगी। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये कंसोल कनेक्शन आपको मिल गया यहाँ पे। जैसे अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो देखिए आपका कंसोल कनेक्शन यहाँ पे मिल गया। बट द प्रॉब्लम इज कंसोल कनेक्शन तो मिल गया लेकिन फायरवॉल अभी भी ये बूट कर रही है और ये अप नहीं आई है। तो ये थोड़ा सा फनी हो गया। ये रिस्टार्ट करके मैं एक और फाइल तब तक ओपन कर लेता हूँ 9.0 के। मुझे एक सेकंड दीजिए बस आप लोग, थोड़ा सा मैं 1 मिनट स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं फटाफट थोड़ा रिसोर्स दे देता हूँ ताकि ये फटाफट हो जाए। सो हाँ, बस 1 सेकंड मुझे दीजिएगा बस आप लोग। Okay, so probably all set. Let me एक और को बस पावर ऑफ कर दूं। बस all done. Let me share my screen. ठीक है, so let me share my screen again. तो कहाँ गया मेरा, ये रहा। So let me just connect. So कभी भी कोई फायरवॉल को आप ऑन करते हो, राइट, चाहे वो 9.0 या 10.0 है, तो इसको बाय डिफॉल्ट कुछ टाइम चाहिए होता है इसको ऑन होने के लिए, राइट। इसको कम से कम आपको 5 to 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम यू रिक्वायर्ड 5 to 10 मिनट। सर 9.0 10.0 वर्जन है ना इसके? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये वर्जन हैं। तो जैसे फायरवॉल आपकी स्टार्ट हो रही है तो फायरवॉल की जो वर्जन आती हैं ये कई तरह के वर्जन आते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ये आपका मतलब 10.0 का वर्जन लेटेस्ट चल रहा है। इसके कई सारे सब वर्जन हैं, ठीक है। इसके पहले जो था मेरा 9.0 का है, उससे पहले 8.0 का वर्जन है, उसके 7.0 का वर्जन है। तो ये सारे मतलब लेटेस्ट 10.0 है। तो ये वाली फायरवॉल मैंने ओपन किया, ये 9.0 की फायरवॉल है। ये मैंने जो ट्राई कर रहा था अभी कराने के लिए, समाउ ये स्टार्ट हो गया। ये वीएम में कई बार ऐसी दिक्कत आती है, तो ये 10.0 की है। तो मैं आपको दोनों ही पे ही लैब करके दिखाऊंगा कि करके, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम्स, ठीक है। जब भी आप स्टार्ट करोगे तो कोई भी नया फायरवॉल, तो एटलीस्ट आपको वेट करना है, आपको कम से कम 5 to 10 मिनट वेट करना है मिनिमम। आपको जब भी स्टार्ट करो 5 to 10 मिनट्स आपको वेट करना है। जब आप वेट करोगे
तब फायरवॉल पूरा रिबूट होगा, ये पूरा इसके डीमंस हैं सिंक होते हैं, डीमंस सिंक होने के बाद यू कैन टेक अ कंसोल एक्सेस। जैसे अभी स्टार्ट किया मैंने तो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब भी कोई फायरवॉल का आप लॉगिन करते हो, कोई भी फायरवॉल जो हो 9.0 के ऊपर, ठीक है, 9.0 के ऊपर क्या है, 10.0 है, तो आपको डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ द फायरवॉल क्या मिलेगा, वो मिलेगा एडमिन। पासवर्ड क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको एडमिन। आपको फर्स्ट टाइम जब एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा ही। कोई भी फायरवॉल जो 9.0 का है या 10.0 का है, जब भी आप इसको करोगे तो इसको फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करने को इसको बोलेगा, तो यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। लेकिन अगर यही आपकी फायरवॉल अगर 7.0 की है, राइट, या आपकी 8.0 की फायरवॉल सीरीज की है, इन पे आपको बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर नेम पासवर्ड होता है, और इस पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाएगा एंड डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो आप आसानी से बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी मैं 9.0 या 10.0 पे जब भी हम काम करेंगे तो हम इसको चेंज कर लेंगे। 10.0 का यहाँ फिक्स पासवर्ड मैंने कर रखा है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अपकमिंग सेशन में। बट 9.0 पे जब भी आप करोगे, मैक्सिमम लाइव आप लोग 9.0 पे करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे हर बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये बूट हो रहा है, तो लेट देम बूट। एक बार ये बूट हो जाए तो वी कैन स्टार्ट। तब तक मैं इसका देख लेता हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये वाली फाइल भी हमारी बूट हो रही है। These are trying to enter in the configuration stage. तब तक कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो आप लोग, मैं बताते रहूंगा आप लोग को, थोड़ा हमारा इंटरेक्शन भी होता रहेगा। मीनवाइल जब तक फाइल हमारी बूट हो रही है तब तक किस तरह का कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था मुझे बताओ आप लोग। आई कैन से यूट्यूब पे कुछ कुछ क्वेश्चन है कि आई एम इंटरेस्टेड बट नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट। अली खान जी पूछ रहे हैं। अली खान जी जस्ट कनेक्ट विथ अस, ठीक है, एंड डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपके लिए राइट पाथ होना चाहिए, राइट। फिर हमारे पास एक क्वेरी है कि लैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो लैन और वैन बेसिकली होता क्या है कि आपके दो कनेक्शन होते हैं। एक आपको वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसको आपको इंटरनेट से कनेक्शन करते हो, और एक आपके घर के ऑफिस के अंदर जो भी लोकल नेटवर्क होता है जिसके अंदर आप खुद अपने लैपटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो। तो वो वाइड एरिया की जब बात आती है, जब इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो तो आप उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हो। जब आपके होम ऑफिस नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, राइट। सो दिस इज लाइक डिफरेंस। सो आई होप ये बेसिक सीसीएनए का पार्ट है, तो अगर आप सीसीएनए करोगे तो डिटेल में आप आंसर इसको मिल जाएगा। सर ये बोला था, हाँ हाँ बताइए। जैसे क्लासेस सर खत्म होने या बीच में इंटरमीडिएट में, सर ये थोड़ा बताइए, मतलब प्रैक्टिकल करके सर दिखाएगा कि जब फायरवेल पे अटैक होता है लाइव में, तो उस पैकेट को कैसे, मतलब अलर्ट मैसेज कैसे मतलब मिले, अगर हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि नॉक में तो 24/7 चलता रहता है, तो अगर लाइव कर रहे हैं तो हमें वो अलर्ट कैसे दिखे, और पैकेट कैप्चर कहाँ से, मतलब कहाँ से ये बिल्कुल बिल्कुल, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दीज आर द पार्ट ऑफ द कोर्स, और मैं एक एक चीज करके लाइव ही दिखाता हूँ, राइट। जितनी भी चीजें है ना, इस सारी चीज पैकेट कैप्चर से लेकर डीबग से लेकर, राइट, और आपकी बिल्कुल एक एक कैसे वायरस अटैक होते हैं, कैसे आपके वल्नरेबिलिटी अटैक होते हैं, कैसे डॉस अटैक्स होते हैं, तो ये चीजें मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास टूल है, काली लिंक्स मशीन के टूल हैं, अलग अलग तरीके का मेरे सर्वर इंटीग्रेट कर रखा है लैब्स में। लाइक आपका बेसिकली एडी सर्वर इंटीग्रेटेड है, एफटीपी सर्वर इंटीग्रेटेड है। तो एक एक चीज मैं करके आप लोगों को बिल्कुल तसल्ली के साथ दिखाऊंगा कि देखो ऐसे चीजें होती हैं, और इस तरीके से आपको अलर्ट दिखता है, और इस तरीके से आप इस पे मॉनिटरिंग है या कुछ भी आप इस पे कर सकते हो। तो वो सारी चीजें। सर ये हाँ बताइए। 2-4 साल पहले सर, ये गूगल पे जब कुछ टाइम के लिए अटैक हुआ था, शायद आपको पता भी होगा। हाँ हाँ। तो सर ये इतने, मतलब गूगल पे तो काफी, मतलब काफी क्या यूनिवर्स की वो तो है, फिर भी उस पे अटैक, मतलब वो समझ में नहीं भी आता। देखो अभी क्या है ना कि कंपनी कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में लोग जो है ना बहुत ब्रिलियंट हैं, ठीक है। तो वो ना आप कितनी भी देखो, आप सिंपल से ही सोचो कि आपने आप एयरपोर्ट देखा होगा, आप लोगों ने मेट्रो देखा होगा, राइट, रेलवे स्टेशन देखा होगा, राइट। आप कितनी अच्छी सिक्योरिटी रखते हो ना, कि अपने हिसाब से गवर्नमेंट बेस्ट सिक्योरिटी रखती है कि यहाँ पे किस तरह का कोई भी मतलब कुछ अनहोनी ना हो, राइट, किस तरह का मतलब नॉनसेंस ना हो वहां पे, राइट। फिर भी करने वाले लोग कहीं ने कुछ ना कुछ लूप होल खोज लेते हैं, राइट, एंड दे डू समथिंग, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि एरोप्लेन भी हाईजैक हो जाती हैं, राइट, Yes, sir. हुआ भी है। तो चोरी इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोरी करने
हाँ चोरी करने तो के लिए ये पुलिस से ज्यादा दिमाग होनी चाहिए। हाँ तो जो हैकर्स होते हैं ना, बेसिकली जो हैकर होते हैं, जिनका बिजनेस ही यही है, जिनका यही काम ही है, तो उनका यही काम होता है कि लूप होल खोजना है। और हर कंपनी कितना भी बढ़िया कोई प्रोडक्ट बना दे, उसके अंदर कमियां जरूर रहता है, राइट। दैट इज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं होती जो आप ये बोलो कि इट्स 100% परफेक्ट, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। इट्स ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव इट। ठीक है, तो गूगल ने भी, बहुत बड़ी कंपनी है, दे डिजाइन एवरीथिंग वेरी रोबस्ट पे, बट समहाउ उनके भी पास बहुत सारे लूप होल्स होंगे जिसकी वजह से वो नहीं चला पाए या नहीं कर पाए। तो ये इस तरीके की उनके साथ भी प्रॉब्लम आई, तो राइट। आजकल का एग्जाम कैसा रहता है, सब लोग बताएंगे? इसका एग्जाम भी दे सकते जॉब फॉलो? Palo Alto का, हाँ बिल्कुल एग्जाम हम दे सकते हैं। Palo Alto के हमारे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो मेरे हमारा फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं। सो द सर्टिफिकेशन इज PCNS से, राइट, और PCNSC। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये सर्टिफिकेशन ना दो कोर्स करने के बाद, क्योंकि इस कोर्स में हम दोनों ही सिलेबस कवर कर रहे हैं, कंप्लीट कवर कर रहे हैं, कुछ भी बचेगा नहीं आप लोगों का। सो इसमें हम दोनों ही कर रहे हैं, तो कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आप इसको देने के बाद ही इसको दे सकते हो। आप डायरेक्ट इस एग्जाम को दे सकते हो, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। तो बेसिकली आपको $175 खर्चा करो और एक बार आप एक्सपर्ट बनो ना। क्यों आप एसोसिएट लेवल पर रहना चाहते हो, राइट। सो आप इसको दो और इसके बाद आप सर्टिफिकेशन करके आप कहीं भी उसको अपने रिज्यूमे में, सीवी में इसको दिखा सकते हो। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन बताइए, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास टाइम है। एक हाँ क्वेश्चन सर, हमारे पास है, हाँ बताइए जो सर बताइए। उस कोई एक दिन में से ज्वाइन किया था, आपने शासी के बारे में पढ़ा रहे थे, मतलब हाँ पढ़ा रहे थे। हाँ तो शासी में तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि वो मतलब ऑटोमेटिक, वो मतलब आप उसमें बस जो भी प्रोटोकॉल से सब मतलब इनेबल, जो भी आपको चाहिए वो इनेबल कर दो, बाकी वो अपने से कुछ ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। तो क्या ये नॉर्मली फायरवॉल जो पालो अल्टो सब है और इन सब पे वो हाईली लेवल पे है, क्लाउड पे जो है, क्या ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग टाइप? देखिए, जो सैसी हमारा है, सैसी सॉल्यूशन जो हमारा है, राइट, ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली ये, इसमें आपको ना ही फायरवॉल खरीदना है, ठीक है, ना ही आपकी फायरवॉल को क्लाउड में डिप्लॉय करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आप जो सैसी सॉल्यूशन के जो पार्टनर है, सिक्योर एक्सेस सर्विसेज जो हमारा है, ठीक है, इसमें जैसे मान के जी स्केलर है, आपके इसमें पोलो ऑल्टो है, ठीक है, आपके इसके अंदर मानते हैं कि अभी नेट स्पोक है जो सबसे लीडिंग मार्केट में है। आप इनको रेंट पे करो बस। आप इनको बोलो कि बॉस ना, मेरे को ना कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन चाहिए, मुझे बताओ क्या करना है। तो ये आपको क्या करेंगे कि आपके जो कंपनी का ऑफिस होगा, आपकी ऑफिस के नेटवर्क पे या तो फायरवॉल लगी होगी या तो राउटर लगा होगा। इसके थ्रू अपने क्लाउड में जो इनके डेटा सेंटर्स होते हैं, यकीन है इनके भी डेटा सेंटर है, वहां पे आपका ट्रैफिक सारा भिजवा देंगे, सिंपल। और आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है, मान के चलो आप बैठे हुए हो, आपके पीसी से ट्रैफिक निकला और यहाँ पे या फायरवॉल पे गया, राउटर पे गया और सीधे पहुंच गया इनके अपने नेटवर्क के अंदर। अब इस नेटवर्क के अंदर की सारे जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, राइट, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो प्रॉक्सी हो, चाहे किसी और भी तरीके का आपका सॉल्यूशन हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पहले से सब कुछ लगी हैं इन वेल्ड मैनर। तो आपका जैसे ही ट्रैफिक आता है तो उस ट्रैफिक को चेक करते हैं कि बॉस आप जो ट्रैफिक लेकर आए हो, इज दिस ट्रैफिक इज लेजिटिमेट, वैलिड ट्रैफिक है कि नहीं है, यूजर वैलिड है कि नहीं है। और जो वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है, जैसे मान के चलिए कि वो फेसबुक एक्सेस करना चाहता है, या वो यूट्यूब एक्सेस करना चाहता है, या वो गूगल एक्सेस करना चाहता है, XYZ कुछ भी .com एक्सेस करना चाहता है, क्या वो एक्चुअली अलाउड है एक्सेस करने के लिए। अगर उसका आंसर मिलेगा यस, आपकी वो पॉलिसी यहाँ पे बनी होगी, तो आप एक्सेस कर पाओगे, वरना आपके ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम काम जो फायरवॉल कर रहा था, वहीं पे आपको काम होगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फायरवॉल की जगह एक आपको एक पोर्टल मिल जाएगा, एडमिन UI पोर्टल मिल जाएगा, यहाँ पे एडमिन यूजर इंटरफेस एक मिल जाएगा। उस पोर्टल को आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर से पब्लिक IP के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उस पर आप पूरी अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जो आप फायरवॉल में जैसे आप करते थे वैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके कि फेसबुक अलाउ करना तो फेसबुक अलाउ कर दो, अगर आपको यूट्यूब अलाउ करना तो यूट्यूब अलाउ कर दो, आपको गूगल अलाउ करना तो गूगल अलाउ कर, आप कुछ भी अलाउ कर सकते हो, इट्स योर नीड। तो इस तरीके से सैसी सॉल्यूशन चलता है। ठीक है सत्या जी। हाँ सर, सर एक मिनट सर, जैसे आप बताए यूजर एक एडमिन का एक पोर्ट मिलता है, तो वहाँ जो क्लाउड क्लाउड का एक पोर्ट हमको मिल जाएगा। तो अगर मान लो
क्योंकि बंदे अभी तो वो जो क्लाउड वाले रखे वो कोई भी एक्सपर्ट हैंडल करते होंगे उसको। अगर हम यहाँ से कोई भी बंदा अगर उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको, और कुछ वो पोर्ट में ऐसा कुछ उसको परमिशन कुछ इस टाइप से मिल गया कि वो कुछ दूसरा चेंज कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ? या फिर उसको एक्सेस ही उतना मिलेगा कि आप इतना ही कर सकते हो, बस हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते? जैसे जैसे आप कंपनी में आपका L1 होता है, L2 होता है, L3 इंजीनियर्स होते हैं ना आपके कंपनी में, होते हैं। तो आप L1 इंजीनियर को आप ये थोड़ी बोलते हो कि राउटर पे जाओ और सारी कॉन्फ़िगरेशन कर डालो, आप नहीं बोलते हो ना। आप L1 को क्या देते हो, रीड ओनली एक्सेस देते हो ना। अगर आप L2 है तो उसको भी आप रीड ओनली एक्सेस देते हो, बट लिमिटेड डिवाइस का देते हो। आप डेटा सेंटर का थोड़ी देते हो कि डेटा सेंटर पे जाकर कुछ चेंज कर दो आप, राइट? यू कैन नॉट से, राइट? तो आप जो भी मेन लोकेशन हो वहाँ उन डिवाइसेस का आप पूरा एक्सेस नहीं दोगे। देते भी हो तो वो अगर कुछ चेंज करने जाता है तो वो वेरीफाई कराएगा पहले अपने सीनियर इंजीनियर से, मान के चलो L3 या कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट जो भी है, देन ही विल डू। बट L3 इंजीनियर है या इनके ऊपर L3 प्लस जो इंजीनियर हैं, इनको आप पूरा एक्सेस देते हो। तो जब L3 प्लस इंजीनियर है तो उसको ऑलरेडी आपकी कंपनी ने ये मान के चला है कि इंजीनियर मेरा सबसे बेस्ट है और ये हमारा सब कुछ काम कर सकता है। तो इस तरीके से आपका L3 इंजीनियर हमेशा आपको चीजों को यहाँ पे करता है, राइट? हाँ, तो इस तरीके से रोल बेस, इस तरीके से हम रोल बेस एक्सेस हम बेसिकली वहां भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे हम रोल बेस से डिफाइन कर सकते हैं और वहां पे हम जाकर अपनी फायरवॉल को मतलब जो SASE सॉल्यूशन का हमारा जो पोर्टल होता है कि जो वेंडर का होता है, उस वेंडर को हम बेसिकली वहां इस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए कि आज कुछ फायरवॉल फनी। Azure का काफी चल रहा है, Azure AWS सर, ये क्या चीज है? ये सेफ्टी से अलग है या? हाँ मदन जी, आप पूछ रहे हैं एजोर और AWS के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जी सर। ठीक है, तो आपका जो एजोर सोल्यूशन है, AWS सोल्यूशन है, आपके पास 3 मेजर मार्केट में है। एक है GCP, ठीक है? ये 3 वेंडर हैं, एजोर, AWS एंड GCP, राइट? सो ये बेसिकली आपके क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। इनको हम बोलते हैं क्लाउड बेस्ड, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, जैसे कि इनका बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर होता है, मतलब आपको इतना बड़ा डेटा सेंटर होता है कि इसमें अंदर आपका मतलब कई हजार, थाउजेंड या मिलियंस में टेराबाइट में इनके स्टोरेज होते हैं और उतनी रैम होती हैं, जिसके अंदर ये बहुत सारे जो अपने कस्टमर्स होते हैं ना, इनको इनको बेसिकली वहां पे स्पेस देते हैं। तो जैसे मान के चलो कि एक डेटा सेंटर की एक पूरा एक लोकेशन हो गया, ये मान के चलो ब्लैक बॉक्स जो है, तो इसमें छोटे छोटे कस्टमर को एक एक लोकेशन दे देंगे, एक एक स्पेस दे देंगे बेस्ड ऑन द रेंट। अब इस रेंट के बेसिस पे आप कस्टमर क्या करेगा, अपना सर्वर इसमें डिप्लॉय कर लेगा, अपना राउटर डिप्लॉय कर देगा, अपना स्विच डिप्लॉय कर देगा। तो क्या होगा कि आपकी जो खुद का डेटा सेंटर था जिसको आप पावर सप्लाई देते थे, राइट, इसके अंदर आप एयर कंडीशन देते थे, आपके यहाँ पे इंजीनियर लगते थे, यहाँ पे आपको जो लोकेशन जो आपका ऑफिस था जहाँ पे डेटा सेंटर आपने बनाया था उसका रेंट भी पे करते थे। तो इन सारों का जो खर्चा है आपका पूरा सेव हो गया और आपको इससे कम खर्चे पे आपको यहाँ पे स्पेस मिल गया, जहाँ पे ना आपको पावर की टेंशन है, ना आपकी कूलिंग की टेंशन है, ना आपको इंजीनियर के मेंटेनेंस की टेंशन है। आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे होस्ट करना है और अपने सर्विसेज को यूज करना है। तो पे एज ए गो, उसको सर्विस पे एज ए गो। सो इसमें क्या होता है कि आप पेमेंट करो और उसको आप यूज करो। तो ये आजकल क्लाउड का जो एजोर है, AWS है और GCP है, ये सारे सॉल्यूशन इसी पे चल रहा है इनका, कि जो आपको स्पेस रेंटिंग करती हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे आप लोग पहले आप लोग USB ड्राइव यूज करते थे, राइट, जिसको आप लोग हम पेन ड्राइव बोलते हैं, राइट, USB स्टिक। बट मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में आप लोग इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते होगे। मतलब मेरा पर्सनल ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि पीपल स्टार्ट यूजिंग द गूगल ड्राइव, ठीक है? अब गूगल ड्राइव भी वही काम करता है जो आपका USB ड्राइव करता था। इसके अंदर भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, जैसे आप फोटोग्राफ स्टोर कर सकते थे, अपना सम वीडियो इंस्टॉल कर सकते थे स्टोर। बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इस USB ड्राइव को आपको हमेशा एक अच्छे लोकेशन पे अपने मेमोरी के हिसाब से इसको रखना पड़ेगा, जैसे आपने कहाँ रखा है आप भूल नहीं जाओ, ठीक है? आपको हमेशा इसको मैनेज करना पड़ता है, राइट? लेकिन अगर मैं इसी को गूगल पे रख दूं, गूगल ड्राइव पे, तो इसमें क्या फायदा होगा कि गूगल ड्राइव को बस मुझे अपनी ईमेल और पासवर्ड याद रखना है, राइट? अगर मेरा ईमेल और पासवर्ड याद है तो गूगल ड्राइव को मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे इसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तो आप दिल्ली में हो और अपने होम टाउन जा रहे हो, राइट, अपने मम्मी पापा को अपने फोटोग्राफ दिखाना है, दिल्ली वाले जो आपने घूमा है वीकेंड पे अपने फ्रेंड के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड को भी दिखाना है फोटोग्राफ, अपनी वेबसाइट में डाल रखा है, तो आपको इसको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा, जब ले जाओगे तभी दिखाओगे।
तो हो सकता है रास्ते में कहीं गुम हो जाए बैग आपका, या कहीं पॉकेट से गिर जाए, तो इस तरह से आपका लॉस्ट हो जाएगा। बट गूगल ड्राइव में अगर वही डेटा पड़ा है तो सिंपली क्या करो, मोबाइल खोलोगे या बोलोगे अपने दोस्तों के दोस्त आओ आपको मैं अपने दिल्ली वाले फोटो दिखाता हूँ जो मैं मस्ती किया हूँ, तो वो सारी चीजें आप उसको दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो। जनरली ऐसे लोग करते नहीं है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक यूज करते हैं लोग, वहां पे दिखाते हैं, बट यू कैन डू। आपको वीडियो कुछ और डॉक्यूमेंटेशन दिखाना तो दिखा सकते हो, तो इसमें कोई भी आपका रिस्क नहीं है कहीं पे लॉस होगा या कहीं कुछ और होगा। ठीक है मदन जी। आने वाला फ्यूचर यही चीज है या फिर ये जो हम लोग कर रहे हैं कि इसका रहेगा? क्या बोला जा रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ क्लाउड पे माइग्रेट हो रहा है, तो क्या ये आने वाला फ्यूचर यही है सर? देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रस्ट में इसका जवाब देना ना मतलब थोड़ा सा मतलब मार्केट की समझ रखने के बराबर, मतलब अगर समझ है मार्केट की तो इसका जवाब एप्रोप्रिएट मैं समझा भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। तो आप लोग समझो इसको ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्या फ्यूचर मतलब क्लाउड है क्या। देखो क्लाउड तो है, फ्यूचर क्लाउड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्यूचर क्लाउड है। बट इस क्लाउड के ना दो पार्ट हैं, इस क्लाउड के दो पार्ट हैं। एक आपका प्राइवेट क्लाउड है, एक आपका पब्लिक क्लाउड है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप लोग में से कितने लोग का इसका मतलब पता है कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है और पब्लिक क्लाउड क्या होता है। किसी को है आइडिया कि क्लाउड तो है हमारे पास लेकिन एक प्राइवेट क्लाउड है और एक पब्लिक क्लाउड है, इसका डेफिनेशन किसी को है आइडिया? बताओ मुझे। सर प्राइवेट क्लाउड में हम अपना बना सकते हैं, जैसे ओपन स्टैक के ऊपर बना सकते हैं हम अपना प्राइवेट क्लाउड, और पब्लिक में हम AWS अजोर पे जाके अपना क्लाउड मतलब रख जैसे सकते गूगल हैं ड्राइव अपना। सर, पब्लिक का, गूगल का। ये वेरी जितने नाइस, भी वेरी नाइस। क्लाउड हैं AWS अजोर और ये जितने भी हैं ये पब्लिक क्लाउड है। और हाँ प्राइवेट मेरा हो गया, जैसे मैंने ओपन स्टैक के ऊपर बनाया अपना पूरा क्लाउड, अपना पूरा सेटअप इंटरनल, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे रूट्स वगैरह मतलब जो भी IP वगैरह बाहर किसी को पता चले, तो इस बेस पे हम अपना प्राइवेट क्लाउड बना सकते हैं। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मतलब कि ये आंसर कहीं से मिले, बट इट वाज रियली ऑसम। सो तो प्राइवेट क्लाउड जैसे गौरव ने बताया कि प्राइवेट क्लाउड कि जिस जहाँ पे आप ना खुद अपना क्लाउड बनाते हो, या तो खुद बनाते हो या जो प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो आपके बिहाफ पे एक प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा, आपका सर्वर्स, आपके जितने भी आपके कनेक्टिविटी हैं वो सारी आपके डेडिकेटेड होती हैं। तो ये सिमिलर टू द डेटा सेंटर ही होता है, लेकिन आप इसको मैनेज नहीं करते हो, इसको प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करते हैं। समझो बात को, ये सिमिलर टू डेटा सेंटर ही होता है। जो आपका डेटा सेंटर है, आप बोलोगे कि सर डेटा सेंटर भी यही करता था, एग्जैक्टली, लेकिन इसमें एक एडिशनल ये चीज होती है कि आप इसको मैनेज नहीं करते हो, ये सारी चीजें आप मैनेज नहीं करते हो। बेसिकली होता क्या है कि ये सब प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। लेकिन जब आप पब्लिक की बात करते हो तो पब्लिक में क्या होता है कि आपके पास शेयर्ड एक स्पेस होता है, ठीक है। इन शेयर्ड स्पेस के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, जैसे AWS हुआ, Azure हुआ या GCP हुआ, इसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कस्टमर का सर्वर्स होता है, उनका डेटा होता है, तो उसी शेयर्ड सर्विस में से आपको भी एक छोटा सा स्पेस दे दिया जाता है बेस्ड ऑन योर रेंट, कि आप कितना रेंट पे कर रहे हो, और फिर वो लोग उस शेयर सर्विसेज पे आपका सारा डेटा होस्ट करते हैं। तो क्लाउड इज द गुड फ्यूचर, बट पहले लोग फैशन वे में पब्लिक क्लाउड पे बहुत मूव किए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गया, कोई भी गवर्नमेंट बेस्ड सेक्टर जो हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा होता है, मतलब कहने का मतलब कि वैसा डोमेन जहाँ पे डेटा बहुत ही क्रिटिकल होता है, वैसी कंपनियां जहाँ पे डेटा बहुत ही क्रिटिकल है, दे नेवर गो फॉर द पब्लिक क्लाउड, दे नेवर गो फॉर द पब्लिक क्लाउड। You mean to say तो banking sector, sir? बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो भी क्रिटिकल, जैसे इंडिया का ही मान के चलो आधार का डेटा सेंटर हो गया, तो वो सब पब्लिक में जा ही नहीं सकता। रिकॉर्ड्स। हाँ, तो वो क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके अंदर डेटा जो होते हैं दैट इज नॉट शुड बी लीक्ड। अब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि आपका शेयर्ड सर्वर होते हैं, शेयर्ड रिसोर्स होते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपके जो सेंसिटिव डेटा है दैट कैन बी लीक्ड फॉर समवन एल्स, मतलब कि वो कहीं एक्सचेंज हो जाए, किसी के सर्वर में कुछ और हो जाए, मर्ज हो जाए, तो इसीलिए नहीं आते। तो पहले क्या हुआ कि जब ये पब्लिक क्लाउड अभी 2-3-4 साल पहले आया था तो बहुत फटाफट बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे मूव हो गए, लेकिन आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट आवर गोल,
यहाँ पे हमारे लिए सर्वाइवल करना इज नॉट ओके। और मूव तो कर लिए अपना डेटा सेंटर वहां पे, उनकी वजह से उनके जो कस्टमर थे, जैसे फाइनेंशियल जो कस्टमर थे, उनसे उन लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया कि भाई आपका जो होस्टिंग है वो पब्लिक पे है एंड वी डोंट वांट टू शेयर आवर डेटा ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो ये बड़ी परेशानी हो गई। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट क्लाउड का। फिर बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपको इसमें परेशानी है तो आपको मैं एक डेडिकेटेड स्पेस देता हूं, आपको मैनेज नहीं करना। तो कस्टमर पहले यहाँ पे खूब ढेर सारे गए, बट ओवर द पीरियड टाइम धीरे 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 अब यहाँ पे ये शिफ्ट होने लगे। अब इसका स्केल बड़ा होता जा रहा है। तो क्लाउड इज अ फ्यूचर, बट मोर फ्यूचर इज अ प्राइवेट क्लाउड। अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करता हूँ तो इट्स सिमिलर टू डेटा सेंटर्स, क्योंकि इसके अंदर वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना फर्क होता है कि आप इसको मैनेज नहीं करते हो, कोई और मैनेज करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, या अभी भी किसी को डाउट है इसके अंदर प्राइवेट पब्लिक क्लाउड और क्लाउड के बारे में? हाँ सर, थोड़ा सा है। हाँ बताइए। जैसे सर अभी पब्लिक हुआ और ये प्राइवेट हुआ, ठीक है। पब्लिक का जो डेटा, जो पब्लिक डेटा सेंटर एक तरीके से मानिए, तो पब्लिक डेटा सेंटर में हमको एक स्पेस मिल जाता था आपके अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग। तो जब हमको पब्लिक के डेटा सेंटर में मुझे अपना खुद का एक स्पेस मिलता था जिसमें मेरे ही अकॉर्डिंग कुछ रूल्स लगते थे, तो वो मेरा प्राइवेट हुआ ना सर? आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि देखो एक सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है आपका, ठीक है। अब ये सर्वर है, ये एक यूनिट है, मतलब एक सर्वर है, एक यूनिट है। तो इसके अंदर क्या है कि इसी सर्वर के अंदर मान के चलो इसमें 1000 GB रैम है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है। आपको इसमें 500 टेराबाइट, इसमें जस्ट एक बहुत छोटा है, 5000 ले लो, टीबी इसमें आपका सॉरी स्टोरेज है, ठीक है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, 1000 एंड 5000 आपका स्टोरेज इसके अंदर है। आपने सर्वर ले लिया, अब इसके अंदर आपके प्रोसेसर भी बहुत सारे होंगे हाई कैपेसिटी के, तो वो सारी चीजें होंगे। आपने क्या किया कि आपने 10 कस्टमर बेस को बांट दिया इस तरीके से। इसको आपने फिजिकल रिसोर्स को आपने 10 कस्टमर में बांट दिया। कस्टमर आपने ए रख लिया, इसको बी रख लिया, सी रख लिया, डी रख लिया, ई रख लिया, एफ रख लिया, जी एच आई, ये सारे कस्टमर हो गए। आपने इसको 100 GB रैम दे दिया, इसको भी 100 GB दे दिया, इसको भी 100, 100, 100, 100, 100, 100 और 500, 500, इन सबको आपने मान के चलो कि 10 है, पता नहीं कितने हैं, आपने इस तरीके से इनको आपने स्टोरेज दे दिया। तो देखो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए डेडिकेटेड स्पेस है, बट ऐसा नहीं है, ये शेयर्ड स्पेस है। आप जैसे जाते हो, आप जाते हो, आप कभी पीजी में रहे हो, आप पीजी में रहे हो, आप पीजी में रहे हो, हाँ रहे होगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपको आप रूम लेते हो वहां पे, राइट। अब उस रूम के अंदर आपको 3 बेड लगा के दे दिया जाता है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरा ड्रॉवर ये है, इसमें मैं अपना सामान रखूंगा, ये ड्रॉवर मेरा है, ये मैं सामान रखूंगा, ये ड्रॉवर मेरा है, ये सामान रखूंगा, बट इसका डोर एक है। अब आप चले गए कहीं घूमने के लिए, ठीक है, और ये भी फ्रेंड कहीं चला गया घूमने के लिए, तीसरे के मन में कुछ दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए, ठीक है, हो सकता है कि आपका ड्रॉवर तोड़ के और आपकी कुछ पर्सनल चीजें वो ले ले, हो सकता है ना ऐसी बात, क्योंकि हाँ, वो ये शेयर्ड है। हो सकता है सर। ये हो सकता है ना, शेयर्ड है। हाँ, तो ये शेयर्ड है, लेकिन अगर आपके पास एक डेडिकेटेड रूम होएगा जिसके अंदर आप ही रहोगे और आपका सामान रहेगा, तो कोई देख ही नहीं सकता है क्या है। अगर आप गए तो देयर इज अ लो चांस कि इसका कोई सिक्योरिटी ब्रेक हो। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जहां पे शेयरिंग होती है वहां पे चांस होता है कि देयर इज अ हाई चांस डेटा कैन बी ब्रीच। आई होप कि आपको हाँ, एग्जांपल ये थोड़ा दिमाग में बैठ गया होगा। क्या कोई भी है, जैसे सर लैपटॉप हो गया, उसमें 3 ड्राइव बी सी डी ई रहता है। अगर ई में हम पासवर्ड लगा दिए, मेरा हो गया, और जो डी है वो दूसरे का है, लेकिन है वो एक ही लैपटॉप में, एक ही तो लैपटॉप में वो बस। अटैक कर सकता है। अगर मेरे पास दूसरा राइट लैपटॉप होगा तो वो प्राइवेट हो जाएगा फिर वो। राइट राइट ठीक है, ठीक है। तो भी अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप पर्सनल करा के जाते हो बड़ा आनंद से जाते हो, बट उसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सेम ये है कि आप वही प्राइवेट डाउट था मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हाँ तो हम प्राइवेट उसको ले ही रहे हैं, तो फिर वो पब्लिकली कैसे चला गया अभी? ये ठीक है दादा। ठीक है। तो देखिए समहाउ हमारी फायरवॉल भी थोड़ा अप आ गई है, ठीक है, बड़े स्ट्रगल के बाद इसको भी ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। तो चलो ये वाली आई है ना फायरवॉल हमारी, हाँ ये वाली आई है।
तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ मैनेजमेंट पे। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्वेश्चन बहुत पसंद है और मेरे को ओपन डिस्कशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कोई भी बिना हेजस के किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं हेल्प करूंगा। सर ये सिलेबस जो रहेगा वो पीसीएनएसी का ही रहेगा ना? हाँ, कंप्लीट अभी सिलेबस में आपको एक बार गो थ्रू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक बार दिखाता हूँ, पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ लॉगिन करके। एडमिन मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला है इसका, ठीक है, यूजर नेम डाला, पासवर्ड नहीं डाला अभी तक। तो सर स्टडी के बाद क्या हम प्रोडक्शन मोड में काम कर सकते हैं सर बेसिस ऑफ बाय बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन? 100% यू आर लाइक एबल टू वर्क इन द प्रोडक्ट। आपके पास लैब रहेगा, मैं लैब एक्सेस अरेंज, विशाल सर हैं, अभिषेक सर हैं, दे विल हेल्प यू इन द लैब्स, राइट। तो आपको लैब इतना मिलेगा कि आप आराम से करो और पूरा अपना जितना भी आपको डाउट्स है वो सारा लैब पे आप क्लियर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। सर आप और क्वेश्चन बिल्कुल अभी कैसे मेरे यहाँ पे आई एम मैनेजिंग, मैं तो राउटिंग स्विचिंग बन रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्सस और मेरे यहाँ पे एफटीडी मैनेज कर रहा हूँ, सिस्को एफटीडी। बट अभी मुझे लगता है सितंबर के बाद वो माइग्रेट होगा पालो अल्टो पे। राइट। ओके, तो उनका एएसए है, बट वो वहाँ पे नॉर्मल उनका नॉर्मल एक्सेस फायरवॉल के लिए, बट उनका जो एफटीडी है वहाँ पे क्लाइंट जो खुश नहीं है, जो दे आर इनटू इंश्योरेंस फ्रॉम, तो उनको जो है ओके। पालो अल्टो के लिए वो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। तो जो अभी सितंबर के बाद मुझे आफ्टर 3 मंथ्स टाइम उनका वो माइग्रेशन फिर चालू होगा। नील आप बिल्कुल टेंशन ना लो, द कोर्स कंटेन डिजाइन इन दिस वे कि आपको बिल्कुल जीरो से लेकर डेप्थ तक नॉलेज मिलेगा, राइट। सो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। दिस इज बिकॉज माय मुझे माइग्रेशन पर्सनल। नहीं करना है, तो मुझे वो थोड़ा तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि देखो, आपको पहले तो माइग्रेशन से पहले आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। जब एग्जैक्टली तक आप सर। प्रोडक्ट नहीं समझोगे देन कैसे माइग्रेशन कर दोगे। आपको ये नहीं एब्सोल्युटली। पता है यस कि यस पैलो सर। अल्टो में कैसे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसकी लाइसेंसिंग करते हैं, कैसे उसको बाकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पॉलिसी कैसे बनती है। तो हाँ, आपका सिस्को एएसए पे पॉलिसी बनी हुई है, सेम पॉलिसी आपको माइग्रेट करना है, तो कैसे करेक्ट करोगे आप। करेक्ट सर। तो यस। आपको सिस्को तो पता है कि आपको कैसे वहाँ पे एसीएल बनाना है, कैसे पॉलिसी बनाना है, बट जब आप आएगी पालो अल्टो के बाद तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, यस राइट। यस, उसका यूजर फ्रेंडली इतना हो गया ना, बिकॉज कभी उस पर काम नहीं हाँ, किया और अभी प्रैक्टिस के लिए डिवाइस भी नहीं है। जब अभी मैं ईमेल दूंगा ना, देखे। मैं दूंगा हाँ सर, आपको, टेंशन एग्जैक्टली। मतलब। हाँ, यहाँ पे आप और बिल्कुल प्रैक्टिस करो आराम। इसके साथ स्टडी मटेरियल भी रहेगा सर, नोट्स रहेगा तुम्हारे पास? बिल्कुल आप लोग के लिए पूरी स्टडी मटेरियल है। देखो, आप लोग के लिए सब कुछ है, बुक्स हैं, पैनोस 9 की बुक है, पैनोस 10 की बुक है, राइट। आपकी सारी सीएलआई कमांड है, आपके पास पूरा डिबग कैसे कैसे लेते हैं वो सब कमांड है। आपको पैकेट कैप्चर कैसे लेना है, सीएलआई कमांड, हार्डवेयर स्टेटस, तो इतने स्टडी मटेरियल आपके पास हैं कि आप लोग पढ़ के परेशान हो जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होने वाला है। मतलब इट्स होल कलेक्शन ऑफ द पालो अल्टो से कोई चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो करेक्ट। इट्स ऑल गोइंग टू बी शेयर्ड विथ यू ऑल, ठीक है, so उसकी टेंशन मत लो। अगर कुछ लगता है कि मुझे और चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, आई विल फिगर आउट, क्योंकि मेरे पास थैंक पालो यू अल्टो के ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स हैं, आई कैन गेट एनी डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। थैंक यू सो मच हाँ, सर। वेलकम। सो लेट मी सी, सो एडमिन यूजर नेम पासवर्ड में डालता हूँ। तो अभी इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि अभी तक लगता है कि फायरवॉल हमारी रेडी नहीं हुई है, बट लेट मी सी। सो जब तक इनकरेक्ट बताएगा, जब तक हमारी फायरवॉल रेडी ना हो जाए। सो अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है। तो तो ये गलत पासवर्ड दे तो इसका मतलब ये समझना ना आप लोग कि अभी तक फायरवॉल आपकी रेडी नहीं होगी। जब आपकी फायरवॉल रेडी हो जाएगी तो अपने आप ही सही फायरवॉल अपने आप ही ले लेगा पासवर्ड। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत देर से मैंने लैब स्टार्ट नहीं किया था, तो ये आज हो गया, वरना इतना टाइम नहीं लगता है, इट्स वेरी क्विक, 5-10 मिनट में हो जाता है। बट आज आई नीड टू रीस्टार्ट द सर्वर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीएम, जो मैंने गलत पोर्ट ओपन कर लिया था, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, सोचा कि हो जाएगा, बट ये हो जाना चाहिए। तो 4 मिनट और वेट करते हैं, लेट मी सी। इनकेस अगर नहीं होता है तो नो वरी, आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। जहां से छूटा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी समझ में आ ही गया, मैं फिर से इसको वहीं दोबारा थोड़ा सा रिकैप करके इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, बट लेट मी ट्राई, प्रोबब्ली हो जाएगा ये। सर कल भी क्या? क्लास रहेंगी सैटरडे संडे? नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। ये हमारा जो बैच है इट्स अ वीक डेज बैच, तो मंडे से क्लास होगी आप लोग के, मंडे से क्लास होगी। सर हाँ टाइमिंग सेम रहेगा? हाँ, टाइमिंग 8 रहेगा आप लोग का, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड है कि 8 हाँ to 8 to 9:30, ओके सर। ठीक है ना, 1.5 घंटे। आज के क्लास में भी
अच्छा सर, बढ़िया था। हाँ कोई बात नहीं, आगे के भी सेशन बहुत मजेदार होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप देखो पालो अल्टो लॉग इन हो चुका है, ठीक है। सो मैं 10-15 मिनट और लूंगा आप लोग का, ठीक है। तो फाइनली वी आर इन द पालो अल्टो फायरवॉल। तो ये CLI एक्सेस है पालो अल्टो फायरवॉल, इसको बोलते हैं हम बेसिकली CLI एक्सेस। तो पहला कमांड आप लोग क्या चलाना है यहाँ पे, देखो पहले बात मैंने बताया था कि जब भी फायरवॉल लोगे तो उसके अंदर एक हार्ड, हेलो इसका स्क्रीन बड़ा कर लो पालतू। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड मुझे दे दो, बस थोड़ा दिखा लूँ फिर आप लोग करता हूँ साइड बाय साइड। तो 1 मिनट रुको, बोर्ड में करने की कोशिश ही कर लेता हूँ थोड़ा सा आपकी बात के लिए, रुक जाइए। अभी ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ सर ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो इंटरफेस होता है इसके अंदर एक हार्डवेयर आईपी होती है 192.168.1.1। जब भी आप फायरवॉल खरीदोगे तो इसके पास मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब वीएम के पास, वीएम के केस में आईपी ये नहीं होता है, कई बार नहीं होता, कई बार ये मिल जाता है, आपको डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में डिप्लॉय किया है, लेकिन ये नहीं होता जनरली। तो इसको देखने के लिए ये आईपी है कि नहीं है मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे, कैसे चेक करेंगे? तो एक कमांड होती है सो सिस्टम इन्फो। पहला कमांड आपको चेक करना है कि अगर आपने कंसोल ले लिया फायरवॉल को, तो पहले तो वो कंसोल लेना पड़ेगा। अगर ब्रांड न्यू फायरवॉल है सो यू नीड अ कंसोल, बिना आप उसके कैसे कर सकते हो? सो बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए कि आईपी है कि नहीं है कंसोल के थ्रू, तो आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा सो सिस्टम इन्फो। जैसे ही आप कमांड चलाओगे तो एक आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो मैंने बताया था कि ये 7.0 सीरीज की फायरवॉल है, तो इस पे ऑलरेडी आईपी पड़ी हुई है, देखो ऑलरेडी। लेकिन अगर 9.0, 10.0, 8.0 की फायरवॉल देखोगे तो उस पे आईपी नहीं आती है, आपको मैनुअली डालना पड़ता है। अगर वीएम आपका है 9.0, 8.0, 10.0 तो ये आईपी नहीं मिलेगा, तो आपको मैनुअल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आईपी पड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आईपी पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है 7.0, लेकिन आप 9.0 पे करोगे तो आईपी ये नहीं मिलेगा, आईपी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये फिजिकल फायरवॉल है, अगर ये फिजिकल फायरवॉल तो 100% आईपी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है अपने पीसी पे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको जाना है इस पीसी पे, इस पीसी का पासवर्ड क्या है, इस पीसी का पासवर्ड आप लोग लिख लो 123 है। आप लोग जब भी लॉग इन करोगे तो इस पीसी का पासवर्ड 123, तो आप लोग जाना है यहाँ पे 123 टाइप कर देना है बस। इसको इंटर मार दो आप लोग, ठीक है। इंटर मारने के बाद इसको अगर भेजना है ब्राउजर में तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये जो दिख रहा है ना ओपन इन द सेपरेट विंडो, तो यहाँ पे चला जाएगा ब्राउजर के अंदर, ये ब्राउजर में चला आएगा। तो कोई भी अगर आपको डेस्कटॉप पे जो आइकन देख रहा है इसको ब्राउजर पे, तो यहाँ पे ब्राउजर में भेजना, तो यहाँ पे क्लिक कर दो आप लोग, ये चला जाएगा। और इसके रेजुलेशन थोड़ा सेट करना है, थोड़ा और अच्छा दिखना है इस पीसी को, तो स्क्रीन रेजुलेशन में जाओ, ठीक है। और जाने के बाद आप लोग करो क्या यहाँ पे आप लोग ये वाला रेजुलेशन ले लो, तो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखने लगेगा पीसी है, मतलब एक्चुअल फीलिंग आने लगेगी कि हम लोग सही में पीसी में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका कर रहे हो, देखो सुंदर दिखने लगा अभी। तो मैंने क्या बोला कि हमारी पीसी से पालो अल्टो फायरवॉल RJ45 केबल से कनेक्टेड है ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस। अब ये कनेक्शन हो गया और इसकी आईपी हमारी ये है। तो अब मुझे पीसी पे जाना और पीसी की आईपी चेक करना है कि ये पीसी तुम्हारी आईपी क्या है। सो मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग में चला और यहाँ पे देखो अपीपा आईपी एड्रेस है, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। तो मुझे इस पीसी को आईपी देना पड़ेगा, कौन सी रेंज का, सेम रेंज का जो फायरवॉल पे है विद सेम सबनेट मास्क। तो मैं इस पीसी पे गया, नेटवर्क पे गया, यहाँ पे ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप अगर मिस हो, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, क्योंकि ये सब आपका डे 0 के लिए लैब है। मतलब जब भी आपके पास लैब एक्सेस मिलेगा तो पहले दिन आपको यही करना है। इसको मैं डे 0 बोलता हूँ इसलिए कि वहां से आपका बेबी स्टेप स्टार्ट होता है, आप लर्निंग की तरफ जाते हो कि फॉलो टू फायर लॉगिन कैसे करते हैं। जब तक वो लॉगिन नहीं करोगे आगे चीजें कैसे सीख पाओगे आप। तो यहाँ पे लैन कनेक्शन पे गया मैं, लैन कनेक्शन पे गया और यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे आईपी डाल दिया। सो आईपी 192.168.1.2 डाल दिया मैंने। यहाँ पे 1 मेरे फायरवॉल पे है, मैंने 2 यहाँ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे सबनेट मास्क अपने आप ले लिया, और गेटवे डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप डालना चाहो तो डाल दो, ठीक है। वरना एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो अपने आप ही बात कर लेगा। आप चाहो तो वही पॉलिटिक फायरवॉल जो आईपी वो डाल दो गेटवे ऐसे, ये कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे जाओगे दोबारा से, अगर मैं यहाँ देखूंगा
तो यहाँ पे कुछ कुछ वो आया कि नेटवर्क एक्सेस आपको आ गया, तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करो तो देखो आपको आईपी मिल गया। अब जैसे ही आईपी आपको मिला तो दूसरा तरीका क्या है, आपको पिंग करके देखना है कि मेरा आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं पिंग करके देखता हूँ, मैंने यही बताया था आपको। तो पिंग 192.168.1.1 और ये देखो पिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अब मैं इस पीसी से इस फायरवॉल को पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब ये पीसी टू फायरवॉल हमारा बातचीत स्टार्ट हो चुका है। पीसी टू फायरवॉल हमारा बातचीत स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास कंसोल एक्सेस ये है पहले से। अब मुझे इस फायरवॉल का जीयूआई एक्सेस लेना है। सो हाउ आई कैन टेक द जीयूआई एक्सेस? जीयूआई एक्सेस लेने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए। तो आप जाओ इस पीसी पे और ओपन करो एक ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, आपको जो पसंद हो, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, कुछ भी आप खोल लो यहाँ पे। मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ मोजिला क्रोम, ठीक है। तो लेट देम ओपन। ये खुल गया, ठीक है। अब जैसे ये खुला ब्राउजर हमारा, ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर टाइप करना https यहाँ पे 192.168.1.1 जो मेरी फायरवॉल की आईपी है वही ब्राउजर के अंदर डालना है, ठीक है। 1.1 है तो मैंने यहाँ पे डाला और मुझे डाल देना है, यहाँ पे एंटर मार देना है बस, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर मार देना है। अपने आप अगर मेरी फायरवॉल पिंग हो रही है तो ये अपने आप ही मेरा फायरवॉल पे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, कुछ वार्निंग या कुछ विंडो देगा यहाँ पे इस तरीके का। ये बोल रहा है कि नेटवर्क इज नॉट सिक्योर, कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस तरीके का मतलब ब्राउजर बेस्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो वार्निंग आ रहा है। तो आप एडवांस पे क्लिक करो यहाँ पे और प्रोसीड विद अनसेफ पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ पे फायरवॉल के ब्राउजर सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है, हमारे पास लाइसेंस तो है नहीं कि हम सर्टिफिकेट लें, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। जैसे ही आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का आपको एक पालो अल्टो का विंडो दिखेगा, जो बहुत ही बेसिक दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी मैं 7.0 पे लॉगिन किया हूँ। अगर 9.0 पे करता, 10.0 पे करता तो बड़ा सुंदर सा यहाँ पे ब्राउजर बेस्ड विंडो दिखता। ये काफी ओल्ड iOS वर्जन है, तो इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको यहाँ करना क्या है, सिंपली आपको यूजर नेम एडमिन टाइप करना है और पासवर्ड को भी एडमिन टाइप करना है। जैसे ही आप यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड टाइप करोगे, आपका फायरवॉल का डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। जो हम CLI से लॉगिन कर रहे थे वही अब हमारे पास CYE का आ जाएगा। आप ओके कर दो ऊपर में, और यहाँ पे देखो क्रिएटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन, प्लीज वेट, ये कुछ बता रहा है। तो देखिए आप लोग बस ये पोलो ऑल्टो का इसी तरीके से या तो आपको ये येलो में मिलेगा या तो आपको ये ब्लू एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जो फेवरेट विंडो है ब्लू एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में मिलता है। अभी जो लेटेस्ट जो फायरवॉल है 10.0 हमेशा आपको येलो में मिलेगा, जो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा। तो दो ही इसके कलर कॉम्बिन थीम आते हैं कलर, इसके थीम को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब थीम चेंज करने का ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हम आगे देख लेंगे। बट इस तरीके का आपका पोलो ऑल्टो फायरवॉल का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसके अंदर आपका डैशबोर्ड एक होगा, एक आपके पास ACC एप्लीकेशन कमांड सेंटर टैब होगा, एक मॉनिटर होगा, एक पॉलिसी होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक नेटवर्क होगा, एक डिवाइस होगा। टैब तो इतने ही हैं, लेकिन इन टैब के अंदर बहुत सारे सब टैब्स हैं। देखो आप डिवाइस के अंदर बहुत सारे सब टैब्स हैं, इसके अंदर भी कुछ कुछ सब टैब्स हैं, यहाँ पे नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे आपके सब टैब्स हैं, यहाँ भी कुछ कुछ इंटरफेस के सब टैब्स हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब टैब्स हैं, इसके अंदर पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारे आपके सब टैब्स हैं, मॉनिटरिंग के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि क्या मतलब होता है, क्या क्या होता है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए L3 L4 इंजीनियर क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का फायरवॉल टू फायरवॉल आपको लॉगिन होता है। अब मान के चलो कि अब ये पालो अल्टो फायरवॉल पे अगर आप लॉगिन करते हैं VM पे और ये IP यहाँ पे नहीं होता, मान के चलो ये IP नहीं होता यहाँ पे, अगर आपको IP असाइन करना होता है तो कैसे करते हैं आप IP असाइन? तो उसका असाइनमेंट करने का जो तरीका होता है, मैं आप लोगों को अगले फायरवॉल पे जब 9.0 पे एक लैब कराऊंगा उसमें मैं दिखा दूंगा, ताकि वहां पे IP नहीं होगा तो उसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है कि वो ट्राई करता है फायरवॉल आपका DHCP से IP लेने के लिए। चलो मैं यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबके पास टाइम होगा ये ना, सेट
डिवाइस कॉन्फ़िग टाइप सिस्टम, ये अभी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग हैं, राइट? तो कुछ मैं यहाँ पे सिस्टम टाइप सिस्टम डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा DHCP का? आई थिंक 7.0 इसलिए इसमें ले नहीं रहा, तो इसलिए मैं बोल रहा 9.0 पे दिखाऊंगा। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, टाइप स्टैटिक और डायनेमिक करने का आ रहा था ऑप्शन, बट इसमें आ ही नहीं रहा है, राइट? सो आई थिंक इसमें, क्योंकि ये काफी पुराना है वर्जन। सर इसमें ऑलरेडी पहले से आईपी दिया होता शायद, वो ये वाला हाँ काम नहीं नहीं, होगा। मुझे DHCP करना था इसमें, तो मैं सिस्टम स्टैटिक की जगह डायनेमिक करना चाह रहा था, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, राइट? DHCP में डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट गेटवे है, डोमेन है, शायद DHCP स्टैटिक का दिया हुआ है सर, इस वजह से डीएससीपी नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली चेंज कर सकते हैं हम, टाइप ना चेंज कर सकते हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। मैं आगे दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टैटिक डायनेमिक, इसलिए दिखा रहा है, बट हमारे पास आता है। नो वरी, मैं ना अगले क्लास में जैसे ही होगा तो मैं आप लोग को उसमें 9.0 पे यही सेम चीज करके दिखाऊंगा, तो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत है। 7.0 मत करना लैब आप लोग, क्योंकि वो चालू नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस पे दिखा दिया, बट विल डिस्कस अबाउट ऑन द 9.0 एंड 10.0, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द GUI एक्सेस। इसको दोबारा हम करेंगे 9.0 पे, 10.0 पे, और फिर हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, बट आप लोग के लिए पहली लैब है, ठीक है? ठीक है सर, रही ये बात कोर्स, हाँ पूछ रहा बताइए। था सर। सर जैसे ये तो ग्राफिकल टाइप का है यूजर इंटरफेस इसका, पालो अल्टो का। तो सर ऐसा भी मतलब होता है क्या कि जैसे हम लोग राउटर स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें जो है ACLI बेस पे वो होता है डायरेक्ट, मतलब उसमें केवल कमांड डालना पड़ता है और कुछ नहीं खुद अपने से, इसमें तो पूरा दिख रहा है, मतलब आप समझ गए ना इन सब डिफरेंस थोड़ा हाँ, तो ये मतलब चीज़ है। इसका भी आप CLI ले सकते हो, इसका भी आप CLI लेकर CLI में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन GUI आपके लिए रिकमेंडेड है, CLI रिकमेंडेड नहीं है। CLI बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, GUI में आप इजीली टैब देखोगे, कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है वहाँ पे चेंज करते जाओगे, तो आपको बस टैब का मतलब और हर एक सेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ट्रबल शूटिंग CLI में होती हैं, वो ही हो सकती है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको करके कैसे होती हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सर क्या GUI में सर राउटर भी मतलब होते कि नहीं अभी तक कुछ? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, GUI में राउटर भी होते हैं, GUI में स्विच भी होते हैं, सब कुछ होता है आज के डेट में। आप जब एडवांस टेक्नोलॉजी में जाओगे तो वो SD-WAN वगैरह में पढ़ोगे आप, तो सब कुछ उसके अंदर GUI में ही होता है, आपको CLI कुछ मिलता ही नहीं है। CLI मिलेगा बट आपको रिकमेंडेड नहीं है करने का। अच्छा, मतलब जो SD-WAN के जो कोर्सेस अगर हो तो उस पर GUI मतलब दिखेगा पूरा, उसमें क्या करना है ये चीज है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब कुछ दिखेगा, सब ठीक है कुछ सर। दिखेगा वहाँ पे। और बताइए कोई क्वेश्चन किसी के पास, क्योंकि आई हैव डन फॉर टुडे, ठीक है? ऑलरेडी वी आर क्रॉस्ड मोर देन 9:30, ठीक है? सो अगर कोई ओपन क्वेश्चन है वी कैन टेक, ठीक है? देयर इज नो प्रॉब्लम। दिन है सैटरडे संडे, तो कुछ गाइड कीजिए कि हम थोड़ा उसके बारे में देखें, ताकि मंडे को थोड़ा अपने आप को और थोड़ा रेडी करके हम। हाँ सर, फर्स्ट क्लास का कुछ नोट शेयर हो जाए कि आप इन लोग को देखो, और फिर उसके वो उसके उस चीज का वीडियो अपन मंडे को मतलब स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम लोग उसको पढ़ ले एंड देन वो अच्छा, क्लास स्टार्ट हो तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना आप लोगों मतलब का होमवर्क क्लास के टाइप का। बाद, हाँ मैं क्लास के बाद ही ना मैं आप लोग को ईमेल, सब लोग अभिषेक से भी ले लेंगे सबसे, आप लोग से, ठीक है? और विल शेयर द एवरी स्टडी मटेरियल ऑन द ईमेल्स, राइट? ईमेल नहीं, गूगल ड्राइव पे होगा शेयर, ठीक है? और आप लोग वहां से एक्सेस करके आप लोग बिल्कुल वहां से देख सकते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हाँ है? मीन सर नेक्स्ट क्लास मंडे को स्टार्ट होने वाला है ना, उसी का सो मंडे को हाँ मंडे को देखो, मंडे अभी मैं क्या करूंगा, ये स्लाइड भी जो भी है ना स्लाइड, इसमें देखो मॉड्यूल 1, इसमें पैकेट फ्लो है, ठीक है? देख रहे हो आप लोग? जी तो मॉड्यूल 1 यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पैकेट फ्लो नहीं, SP3 आर्किटेक्चर। उससे पहले मैं मंडे का जो क्लास होगा उसमें मैं आप लोग को ये फायरवॉल कॉन्फ़िगर करके एक बार और दिखाऊंगा, 9.0 को, 10.0 को, जो 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को सीधा मॉड्यूल पे लैंड करूंगा, क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट जो है बहुत लंबा है, ठीक है? इसके अंदर अभी तक हमने मॉड्यूल की बात ही नहीं की, अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक बेसिक चीजों की। तो यहाँ पे आप लोगों को डीप डाइव में कराऊंगा कि सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फ्लो लॉजिक, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपको 100% जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो पूछा ही जाएगा, इसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो बिल्कुल मैं इस पे बिल्कुल। फोकस करूंगा कि आप लोग का ये मॉड्यूल जो है सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो पालो अल्टो का, वो अच्छे समझ में आ जाए,
इसके साथ इसका फ्लो लॉजिक, जो पैकेट फ्लो इसका है, कैसे इसका पैकेट फ्लो होता है, कैसे कैसे पैकेट का बिहेवियर रहता है जब पालो अल्टो फायरवॉल में जाता है पैकेट, तो बहुत बड़ा है इसका, बहुत सारा सेक्शन है, स्लो पाथ, फास्ट पाथ, एप्लीकेशन आईडी, कंटेंट आईडी, जो थियोरेटिकली आपको समझना है। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट वो मंडे को नहीं होगा ये सारी चीजें, मतलब कमिंग वीक में होगा, 2-3 क्लास ड्यूरिंग द लगेंगे प्रोसेस उसको ऑफ जाने द में। कोर्स। प्रोसेस ऑफ द कोर्स, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ द कोर्स, राइट? So how many So models in this section, sir? In the course, how many models? total module we have 12 module, right? Oh, So module okay. is the प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, नेट पॉलिसी में 4 तरह का नेट समझोगे आप लोग, सोर्स, डेस्टिनेशन, यूटर नेट एंड डुअल नेट। फिर आप इसके अंदर एप्लीकेशन आईडी की डीप डाइव, कंटेंट आईडी की पूरी लैब, जितनी भी लिखी एक भी लैब नहीं मिस होगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है? सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा, जो मतलब इट्स वेरी नॉट इजी टास्क कि सारी लैब कराना, ठीक है? बट मैं सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा, वायरस भी लाइव आपको ब्लॉक करके दिखाऊंगा, स्पाइंग एक्टिविटी भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा, कैसे ब्लॉक होती हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वल्नरेबिलिटी लाइव मैं काली लिनक्स मशीन से जनरेट करूंगा, वल्नरेबिलिटी डॉस अटैक बिल्कुल लाइव करूंगा मैं काली लिनक्स मशीन से, यूआरएल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, ये सारे चीज हम करेंगे, डेटा लीक भी हम करेंगे पूरा, कैसे डेटा लीक होता है एफटीपी सर्वर और पीसी के बीच में थ्रू द फायरवॉल, तो उसको मैं करके दिखाऊंगा, वाइल्ड फायर की लाइव करके दिखाऊंगा, फाइल ब्लॉकिंग के दिखाऊंगा, एसएल डिक्रिप्शंस जो एडवांस है अपने आप में, एंड देन वी लैंड विद आखिरी मॉड्यूल जो हमारा यूजर आईडी, जिसको एडी इंटीग्रेट करूंगा पालो अल्टो फायरवॉल के साथ, बिल्कुल लाइव होगा, कुछ भी थ्योरी नहीं होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, साइड टू साइड वीपीएन जिसमें ग्लोबल प्रोटेक्ट एंड आईपी टनल आप लोग पूरी डीप डाइव सीखोगे, इतने अच्छे सीख जाओगे, कोई भी कुछ पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो। फिर ये सब डैशबोर्ड, लॉगिंग, रिपोर्टिंग, पैनोरामा के बारे में आप लोग सीखोगे, फिर एच एक्टिव पैसिव के बारे में, एक्टिव के बारे में आप दोनों सीखोगे, दोनों लैब करोगे। सो इट्स 100% लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप लोग को पूरा हैंड्स ऑन सीखने को मौका मिलेगा। थ्योरी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट लैब इज द इम्पोर्टेंट, मैं पूरा फोकस लैब पे रहता है, क्योंकि थ्योरी आप कितना ही पढ़ लो, लैब नहीं करोगे तो सब यूजलेस है आपके लिए। सर वो मंडे को सर बता दी, मंडे को अपन क्या मतलब क्लास करके मिलेगा, मैं कौन सी आप लोगों टॉपिक को कवर सेशन करते देता हैं? हूँ, आप लोग 2 चीज पढ़ो मंडे को, एक तो आप लोग ये पढ़ो कि सिंगल पास आर्किटेक्चर क्या होता है, पढ़ जी के आओ, और फ्लो लॉजिक क्या होता है, मैं डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक। क्या सर ठीक है, इसको ताकि अगर इसको अभी पढ़ लेंगे, ओके, आगे इसके हम्म बाद जब डाउट होगा तो मंडे को जब भी क्लास हम्म स्टार्ट होगी तो उसमें अपन उस डाउट को क्लियर भी कर लेंगे सर। अब क्या बिल्कुल बिल्कुल क्लास होगी सर और फिर अपन उसको पढ़ेंगे ना तो मतलब डाउट जो क्लियर होगी नेक्स्ट क्लास में फिर बैकअप हो जाएगा, तो मतलब बैक चले जाएंगे। इससे क्या है कि पहले पढ़ लेंगे और फिर उस क्लास में पूछेंगे लाइव में, तो थोड़ा सर समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2-3 मिनट हाँ मैं जी। ले लूं अब? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन टेक योर टाइम, आई एम डन, ओके, थैंक यू सर। सो जस्ट 2 मिनट। अभी ना हम लोग जब मंडे से ये वाला बैच शुरू हो जाएगा, देन व्हाट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, जो हम पहले भी करते थे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। सो पीछे सेशंस में हमने ओपन फोरम्स जो किए थे उसमें फीडबैक भी लिया था लोगों का, जो लोग आए थे, कि भाई ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, लैब वैब तो पीके सर सब देख लेंगे वो सब, बट उसके अलावा भी जो चैलेंजेस आते हैं हमें, एक तो काउंसलिंग में आता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कौन सा सबसे बेटर रहेगा, एक उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, और दूसरा इंटरव्यू असिस्टेंस मतलब कि इंटरव्यूज में इश्यूज होते हैं लोगों को, जो फ्रेशर्स हैं या जो स्विच कर रहे हैं उन लोगों को, तो उनको हम थोड़ा सा कि इंटरव्यू में जो है फिजल आउट ना कर जाए, इंटरव्यू में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है कभी कभार, या फिर लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ना आता तो हमें बहुत कुछ है, सब तो आपको मिल जाएगा सर ये वॉइस, सर विशाल सर, आपके वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कैसे करे इंटरव्यूअर को जो इंटरव्यू ले रहा है, विशाल सर आपके आपके ना डिलीवरी के लिए मेरी ब्रेक, यस सर, बहुत अभी आ बहुत रही है ज्यादा ठीक? ब्रेक हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, बहुत ज्यादा, कब से ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अभी बोल लो सर। हाँ, नहीं मैं थोड़ा हाँ। छत पे था तो शायद नेटवर्क का इशू हो। तो मैं वही कह रहा था कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जैसे ये बैच शुरू हो जाता है, 2-3 क्लासेस हो जाती है हमारी, थोड़ा आप लोग कंफर्टेबल हो जाते हो कोर्स मैटर के साथ, तो हम रेगुलर बेसिस पे प्रोबेबली एवरी 2 वीक्स टू स्टार्ट विथ, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड एवरी वीक हम एक ऐसा ओपन सेशन रखेंगे जिसमें वी विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू, और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो नेटवर्किंग के हैं, सिक्योरिटी के हैं, क्लाउड के हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स जो 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है, उनको एज गेस्ट स्पीकर हम लेके आए, जो आप लोगों को वो जो इंटरव्यू फोबिया होता है ना, थोड़ा सा इनहिबिशन होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है,
कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्या जवाब इंटरव्यूअर्स को देने चाहिए। जवाब तो हर सवाल का हो सकता है, लेकिन क्या इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, उनके एक्सपीरियंस से हम वो थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश करेंगे प्रोसेस को, ताकि हम जब सर्टिफिकेशन ले लें, और सर्टिफिकेशन लेने का मतलब क्या है, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं जो है स्विच करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीमेंट देखेंगे या पोजीशन की हाइक देखेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी गोना इंट्रोड्यूस फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड्स। थैंक यू सर। काउंसलिंग भी चलती ही रहती है, उसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करके हम करें। बट ये आई थिंक आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में लिख के या मैसेजेस में कि इफ वी ब्रिंग इन विशाल सर एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप चैट अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। देख रहा हूँ। हाय सर, आई एम हैविंग आईटी बैकग्राउंड। सर आपका नाम क्या है? लैपटॉप से नाम आ रहा है, सो वी कैन टेक लैपटॉप से नाम। आई एम हैविंग आईटी बैकग्राउंड विद द L1 and L2 डेस्कटॉप सपोर्ट, व्हाट विल द चैलेंज फॉर द लर्न Palo Alto दिस ट्रेनिंग। सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सो आपका नाम नहीं मुझे पता है, ठीक है, आपका नाम लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, तो आई होप अगर बता दें तो सही रहता है। लैपटॉप टू एवरीवन। यस, मुजामिल, ओके मुजामिल, ओके थैंक्स मुजामिल। ओके सो मुजामिल, देखिए आपका जो डेस्कटॉप सपोर्ट का बैकग्राउंड है उसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग आती है, जिसमें आपको बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बेसिक नेटवर्किंग का मतलब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन आपसे, आपको अगर विलेंस आती है, आपको अगर स्टैटिक राउट डालने आता है, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल की समझ है, मैं हर एक सिक्योरिटी इंजीनियर से बोलता हूँ कि अगर आपको ये नहीं आती है तो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं को विलन समझ में आता है कि मैं स्विच पे विलन दे सकता हूँ, विलन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक राउट कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, आपको ये समझ में आता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, तो यू कैन गो विद द फायरवॉल ट्रेनिंग्स, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले CCNA करो। मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप नहीं सीख सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन आपके लिए चैलेंज आएंगे, क्योंकि आपको विलेन जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा विलेन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब मैं लैब में कराता हूँ, इंटर विलेन राउटिंग कराता हूँ, इवन द फायरवॉल की पार्ट है, लेकिन ये सब करके दिखा दूंगा क्योंकि ये सब चीजें होती हैं फायरवॉल पे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मुझे बता दो कि अगर ऐसी चीजें आती हैं तो यस बोल दो, नहीं आती हैं तो फिर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आपको CCNA का ब्रशअप करना पड़ेगा, या आपको स्पेशल अटेंशन मुझे देना पड़ेगा, 1-to-1 क्लास या कुछ और तरीके से मुझे आपको ये सब चीजें सिखानी पड़ेंगी ताकि आपको फायरवॉल सीख सको। तो हम दोनों तरीके से ओपन है, या तो आप फुल अगर CCNA सीखना है तो CCNA सीख लो, नहीं Palo Alto सीखना है, इफ आर नॉट कंफर्टेबल तो 1-2 सेशन हम ओपन रख लेंगे, इसमें विलेंस के बारे में बात कर लेंगे, स्टैटिक राउटिंग के बाद बात कर लेंगे, तो आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अपने आराम से बाकी फायरवॉल की चीजों को सीख लोगे। ठीक है मुजामिल, ओके? आई थिंक मुजम्मिल के माइक में कोई इशू है, सो ही विल प्रोबब्ली ड्रॉप इन अ मैसेज। ठीक है, आई थिंक वी हैव बोथ कन्वेड आवर एजेंडा, सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। Thank you so much everyone and I wish you very good weekend, right? And I hope कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके मंडे को मिले, and we'll enjoy it together, ठीक है? हाँ बताइए, हाँ बताइए सर। कल इनको का क्लास है ना हमारा 4:30 बजे से। हाँ बिल्कुल, 4:30 क्लास है सर आपका। ओके कल है, ठीक है, मिल मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा कल, ठीक है? गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बाय। Hi everyone, good evening. Let me share my screen. Good evening, good evening. Good evening, sir. Good evening, good evening. I hope you all are doing well. सब अच्छे चल रहा होगा, right? बहुत बढ़िया है, गर्मी ही बहुत है आजकल। गर्मी तो है, बट वन ऑफ द कोल्डेस्ट सीजन मैं बोल सकता हूँ कि काफी 20 years में मेरा खासकर 20 years में नहीं, this has been recorded as the most coolest May in the entire century for India. अच्छा, हाँ जी। I was thinking last 20-23 years somewhere I read. Okay, that's good. So मई में तो almost air condition की जरूरत ही नहीं पड़ी, या कूलर के, ऐसी मौसम बहुत अच्छा था। Anyhow, welcome you all in the GuiNet technology, and I really apologize, I was not well for last 2-3 days, so I was unable to take classes, but feeling well now, right? So let's start in the positive mindset, and really sorry जिनको भी दिक्कतें हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, I hope कि अभिषेक सर ने कन्वे करने की कोशिश की,
बट फिर भी कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। सो सॉरी फॉर दैट। सो सबसे बेटर ना? हाँ, बेटर बेटर बेटर। Good. सो लेट्स स्टार्ट। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर विल स्टार्ट। Okay, so meanwhile, let me just go through that slowly. So what we have done in the previous sessions, right? So we just configured, right? हमने एक बहुत ही ब्रांड न्यू फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की थी और हमने ये देखा था कि फायरवॉल होता क्या है, राइट? और फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वो बहुत ही छोटी सी फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर किया था, छोटी मतलब कि ओल्ड सीरीज फायरवॉल, जिसको मैंने 7.0 सीरीज का फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर किया था। बट आज मैं शायद आप लोग को 10.0 की फायरवॉल लॉगिन करके एक बार दिखाऊंगा और उसका डैशबोर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि 7.0 में बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जो लेटेस्ट है 10.0 है या उससे प्रीवियस 9.0 है। तो सबसे लेटेस्ट ये है, फिर आपका 9 है, फिर 8 है, फिर आपका 7 है। तो ये 8 और 7 आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं। बेसिकली ये मैं पैन ओएस की बात कर रहा हूँ। जैसे आप सिस्को राउटर में iOS होते हैं, इसी तरीके से पालो अल्टो फायरवॉल में हम पैन ओएस बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर वर्जन की बात कर रहा हूँ। सो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट? आई विल शो यू अगेन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द फायरवॉल ऑन पैन ओएस 10, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द एक्चुअल मॉड्यूल जो हमारा है, प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। एंड वेयर विल डिस्कस अबाउट द हाउ प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर हैज बीन डिजाइन फॉर द पालो अल्टो फायरवॉल। और फिर इसका आज तो नहीं हो पाएगा, बट फ्लो लॉजिक भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू कवर इट टुमारो, ओके। सो विल गो स्लोली। इनिशियली हम स्लोली जाते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहे। बट फिर भी आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन, राइट, कि लास्ट सेशन में हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट का सेशन था हमारा। एंड यू गाइज आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट, ड्यूरिंग द सेशन। सो आई वुड लाइक टू आस्क अगेन। आप लोग के पास दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है पूछ डालो अभी, बिल्कुल टेंशन लेने का, बिल्कुल पूछ डालो अभी का भी। सारे क्लैरिफिकेशन दूर कर लो, फिर हम पढ़ाई तो करना ही है, बट डाउट शुड बी क्लियर, ठीक है। सो किसी के पास कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग द क्लासेस और कुछ भी, तो आप लोग मेरे से पूछो। आई विल हेल्प यू आउट कि क्या है, कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। आप लोग बताओ, तब तक मैं ट्राई करता हूँ इसको लॉगिन करने का, देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं होता है। सर मैंने काफी बार ट्राई किया। एक मिनट मदन जी। हाँ बताइए मदन जी, बताइए, अब बताइए। मैंने काफी बार ट्राई किया था वर्चुअल मशीन से। आपके पास 2 मशीन्स हैं क्या? लॉगिन है क्या आप 2 मशीन से कहीं पर? सर ये दो सर एक लॉगिन है शायद मदन जी। हाँ वॉइस एको आ रही है। हाँ, 2 मशीन होगी एक जगह, इसीलिए इको आ रही होगी। तो आप एक को म्यूट कर दीजिए, फिर एक से बात करिए आप। मदन जी बताइए। आई थिंक और एनीवन एल्स, कोई भी अदर, मदन जी के अलावा एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? नो क्वेश्चन। हेलो। हाय या मदन, टेल मी प्लीज। सर मैंने ट्राई किया था उसको एक्सेस करने के लिए वर्चुअल ये अपना फायरवॉल को, लेकिन उससे पासवर्ड हमेशा रॉन्ग ही बोल रहा है सर। अरे हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि आप कौन से iOS को ट्राई किया था लॉगिन करने के लिए, बताइए पहले आप 7. तीनों इमेज हो गए, 7.0 किया, 9.0 किया या 10.0 किया? सर वो मुझे मालूम नहीं है जो फायरवॉल तो वहाँ पे। आपको मैं बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं, तभी मैं बता पाऊंगा। आप अगली बार मुझे, मैं दोनों को बताता हूँ। आप जैसे कोई फायरवॉल लेते हैं ना यहाँ पे, राइट? सो वंस यू सेलेक्ट द फायरवॉल, राइट, तो जैसे मान लीजिए कि ये फायरवॉल है, ठीक है। फायरवॉल शुड बी इन ऑफ स्टेज, ठीक है। तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट में जाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्या वर्जन है आपको दिखाएगा यहाँ पे, देखो इमेज का नेम दिखा रहा ना यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे जी ये वाले। तो अगर 9.0 है, राइट, सो आपको वंस यू स्टार्ट द फायरवॉल कम से कम आपको 10 मिनट वेट करना है, राइट। आपको पहले वेट करना है 10 मिनट मिनिमम। वंस यू वेट फॉर 10 मिनट, आपको यूजर नेम आपको एडमिन डालना है और पासवर्ड भी आपको एडमिन डालना है। 10 मिनट के बाद जब आप यूजर नेम पासवर्ड एडमिन डालेंगे,
तो फिर आपसे पूछेगा कि यू पुट ओल्ड पासवर्ड, तो फिर से आपको एडमिन लिखना है, और फिर से ये न्यू पासवर्ड के लिए आपसे पूछेगा, तो आपको एक न्यू पासवर्ड चेंज आपको डालना, जैसे आपका आप डाल सकते हो madan@14, इस तरह का पासवर्ड डालोगे तो ले लेगा। तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 10 मिनट। वंस यू स्टार्ट द फायरवॉल, डिफॉल्ट जब भी फायरवॉल स्टार्ट करोगे तो यही फायरवॉल स्टार्ट होगी। एंड वंस यू स्टार्ट दिस फायरवॉल, default username is admin, password is admin, and it will ask to change the password. Then you have to put admin, and then you have to put the new password and confirm new password. So ये password आपका फिर सेट हो जाएगा। You got मदन जी? ओके सर, मैं ट्राई कर। हाँ हाँ, आप ट्राई करना, ठीक है, क्लास के बाद ट्राई करना, अभी कोई जरूरत है। Any other questions guys? Hi sir. Hi, Mujammil. Good evening. How are you? गुड इवनिंग सर। मैं सर दुबई से ज्वाइन किया ये क्लास आपकी। Thank you so much. Thank you so much. तो आपका डेमो मैंने यूट्यूब में देखा था, फिर मैंने अभिषेक सर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस भेजा है। तो वही मैं लास्ट सेशन में आपको बताया था ना जी, मैं L1 और L2 बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा हम थोड़ा धीरे चलेंगे तो मुझे भी अच्छा समझ नहीं में आ बिल्कुल जाएगा। मुजम्मिल, बिल्कुल हम हिंदी में बात करेंगे, राइट? जी मोस्ट जी पीपल जी आर लाइक हिंदी स्पीकिंग, तो ये हाँ स्पेशल डिमांड है हमारा बैच का कि सर हमें हिंदी में ही करना है। एंड हाँ आई डेफिनेटली आई विल गो वेरी स्लो। आप लोग जब तक नहीं बोलोगे कि सर आगे बढ़ो, तो मैं नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? दिस इज माय कमिटमेंट, और थ्रू आउट द सेक्शन रहेगा। सो बिल्कुल घबराने की थैंक जरूरत यू नहीं सर। है। हाँ, आप लोगों को हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल किसी भी तरीके से। और आई विल मेक श्योर कि आप लोग एक एक चीज समझ, आप लोग पूछो क्वेश्चन, कभी भी मेरे से जितना क्वेश्चन उसे पूछो। जब तक आप लोग मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, तब तक मैं आप लोगों को फोकस नहीं कर पाऊंगा, राइट? क्योंकि हम सब कुछ वर्चुअली कर रहे हैं। तो आप लोगों को गलत या सही जो भी क्वेश्चन है पूछो एक बार आप मेरे से, ठीक है? सो जी थैंक यू जी मुझे मिल है, ठीक थैंक है? यू विल थैंक यू ट्राई टू थैंक गो इन स्लो। जी मेरा नाम कमाल है। हाय मैं कमाल। कमाल, तो मैंने पता करना था कि ये इसकी मैं आज पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, तो इसकी जो पहले सेशन हो इसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिलेंगी? सो कमाल, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग। आप हमारे साथ पहले भी सेशन किए हैं कोई, क्या SD-WAN वगैरह कुछ भी? हाँ जी किया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं, हाँ, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू शेयर द ईमेल आईडी विद अभिषेक सर, एंड अभिषेक सर विल अरेंज द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, राइट कमाल? जी, अभिषेक सिंह जो कि इस वक्त ऑनलाइन है। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, अभिषेक सर को आप पिंग कर लीजिए, या व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं आप उनको, अभी ग्रुप में भी ऑनलाइन है अभिषेक सिंह, ठीक है? हाँ जी So you can थैंक connect यू him and he will provide everything, right? So no need to worry about that. Thank you Kamal and welcome in Palo Alto batch again. कोई अगर अलग क्वेश्चन सर और? हाँ बताइए शैलेश सर जी। जैसे कि सर मुझे तो फायरवॉल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये कैसे काम हाँ करता है, क्या है सर, इसके लिए हाँ, कुछ प्री रिक्विजिट्स है क्या? नहीं फायरवॉल के लिए अभी जिस हिसाब से आपने मेरे से इनकोर एनआरसी किया है, तो आपके लिए कोई जी प्रीरिक्विजिट नहीं है, राइट? ओके आपके ओके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। आपको अगर बेसिक स्टैटिक राउटिंग आता है, विलेंस आते हैं, तो सब कुछ आपके लिए नया है इसमें, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है सर। क्योंकि आपने काफी दिन से हमारे साथ जुड़े, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपके लिए कोई जी सर। दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। इट्स वेरी इजी फायरवॉल, ट्रस्ट मी गाइस। वन ऑफ द इजीएस्ट फायरवॉल इन द इंडस्ट्री, द पालो अल्टो फायरवॉल। सो पालो अल्टो इसलिए पॉपुलर है, इसलिए सबको यूज करते हैं कि इसको सीखना इतना इजी है, कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना इतना इजी है कि कोई दूसरा फायरवॉल है ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर। सो टेंशन मत लो, बिल्कुल आप लोग सीख जाओगे स्टेप बाय सर ये स्टेप। GUI बेस में है या से कमांड लाइन? कंप्लीट GUI बेस पे आप इसको मतलब ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ बेसिक कमांड लाइन भी इसका आपको पता होना चाहिए। ओके हाँ, दोनों में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको 99.9% वर्क आपको GUI में होता है। इसमें 1% कभी कभी पॉइंट कुछ परसेंट आपको डिबग, कुछ ट्रबल शूटिंग, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीजें आप इसमें अभी भी, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ कैसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है फायरवॉल का, वो आपका बेसिकली CLI में हम करते हैं जब बिल्कुल इनिशियल सर ब्रांड न्यू। कैसे डिप्लॉय करते हैं सर, ये सब थोड़ा बताइएगा। हाँ मैं बताने जा रहा हूँ, आई थिंक आपने पिछले क्लास नहीं ज्वाइन किया, तो मैं फिर से थोड़ा रिकैप करने वाला हूँ उसी को, ओके राइट? ओके ओके हाँ सर प्लीज। ओके okay, so I think we all set, so shall we start now, if we all fine, right? All I right. think so. Yes sir, anything you want to say? No, please proceed. I said that Okay. everybody, I guess you have answered all the questions. Okay, हाँ जी great. मेरे एक और क्वेश्चन ये है कि ये इनकी जो हम लैब्स करेंगे, इनकी कहीं लैब्स मतलब लिखी हुई है कि जो
करना होता है कि क्योंकि प्रॉब्ली आपने बताया होगा तो मैंने मिस कर दिया पहले सेशन। हाँ, एक्चुअली क्या है कि सारी लैब्स हमारी बनी हुई हैं, मतलब आपको जो लैब एक्सेस मिलेगा, यू कैन एक्सेस दिस लैब्स फ्रॉम एनीवेयर। आप देख रहे हैं ये जो यूआरएल है, आप इस यूआरएल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो ये यूआरएल एक्सेसिबल, बट इसके लिए यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, राइट? सो वी विल प्रोवाइड द यूजर नेम पासवर्ड, और प्री डिफाइंड लैब्स ऑलरेडी बनी हुई हैं जो जिसमें मैं सारे सेशंस कराऊंगा। अलग अलग टोपोलॉजी है, अलग अलग लैब्स हैं, राइट? So that is already designed by me, and you guys having the same access what I have access, right? But still, if you guys want कि मुझे कुछ इसमें modification करना है, मुझे कुछ R&D करना है, you can do that, क्योंकि आपको पास full admin access मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो लैब के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इट इज लाइक एडमिन एक्सेस मिलेगा आप लोग को, But my एंड यू कैन। question is different. See, the one you're showing is how to access the lab, but are there any like a document this is okay? Because I might not be using your lab setup because I have my own lab setup. So is there any document I need to follow? Okay, I need to accomplish this in this lab, or Yes. So you or are talking about the something that we lab have to guide. You are follow? talking about the lab guides, right? Yeah, yes, I'm talking about the lab guide. Yes, yes. So yes, we having some lab guides for the complex lab, right? So for like we having the user ID lab guide. So you can see here, it's like one of the complex lab guide, right? So similar, we having the like let me show you, that is the global protect. So this lab guide is created here. You can see step by step you'll find all the That's what I was process. asking. So how do Yeah. we get access to these lab guides? So you'll get these all access along with the videos, right? So whenever Okay. we'll share that video study material, that all will go in the one folder, okay? And you'll get the access of those folder and you'll able to get everything from there, okay? And the last question I have is that do you guys send like a link for the Zoom call every day via WhatsApp, or is it like a standard Zoom call link for every day? Or it keeps on changing? No, Zoom is going to be fixed. So this is like open for today, is just open meeting. So many people join, right? But going from Monday, that is a fixed Zoom meeting. So that is going to be fixed. So one meeting you'll get, and that is going to be available for entire the session. No need to change anything. You have to join just And one Zoom. on Monday, the classes will start, or they will continue from Monday? Like how many sessions I've already missed on this batch? So technically you didn't miss anything. We are not started any module till now. So still probably I'll start tomorrow, because I'll cover the initial setup for the firewall. That is a very basics, right? And I have done 2 sessions where I just discuss about the course contents. I discuss about the benefits of the Palo Alto firewalls. I discuss about in another session certification parts, and then I discuss about why we need the firewalls. These are the basic fundamental I discussed in the previous 2 sessions that was open, and this is also like basic configuration we are going to cover. So technically we didn't miss anything. We are in the 0 step till now, okay? As per the Palo Alto syllabus, okay? Thank you. All right, Kamal, thank you so much. So let's start, guys, right? So the last session we tried to cover, like we tried to just configure the Palo Alto firewall, right? So the idea was कि if you get, I hope कि सबको हिंदी आती होगी, तो काफी लोग को हिंदी में ही समझना है सेशन को. तो the idea was कि like अगर मेरे को ब्रांड न्यू फायरवॉल मिल जाती है, so how can I configure it, right? So how can I configure the brand new firewalls? So मैंने बताया था, just let me recap, कि आप लोगों को सबसे पहली चीजें क्या देखनी है. आपको एक गूगल पे जाना है, right? Just in Google. So just go in the image, and then you will find the image, right? So आपको सबसे पहले visualize करना है कि Palo Alto firewall दिखती कैसी है, right? This is the first step you have to take, right? कि Palo Alto firewall दिखती कैसी है. So आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि Palo Alto firewall का जो फिजिकल आर्किटेक्चर है वो कैसा दिखता है. तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ दोबारा से आप लोग को, ताकि सबको समझ में आ जाएगा. देखो, आप जब भी कोई Palo Alto firewall खरीदोगे, या मतलब आप नहीं खरीदोगे, आपको काम करने का मतलब जस्ट यू गेट अ चांस टू वर्क ऑन द Palo Alto firewall. सो व्हाट यू विल सी कि ये बहुत ही बेसिक फायरवॉल है, मतलब बेसिक नहीं है, थोड़ा सा मिड लेवल का फायरवॉल है, 820 मॉडल फायरवॉल है, राइट? सो इस 820 मॉडल की फायरवॉल के ऊपर आप देखेंगे तो डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल है, राइट? सो दीज पोर्ट्स आर लाइक
you can see here is the HA ports. We having management port, we having the console port, we having some other ports, right? So you can see here, and then USB ports, again console ports, some LED status, right? Same thing I explained in the PA220 in the previous session, right? जिसने भी ज्वाइन किया उन्होंने देखा होगा। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं एंड एवरी पोर्ट्स हैविंग देयर ओन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, राइट? तो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर देते हैं। सो क्या होता है कि ये जितने पोर्ट्स आप देख रहे हो 1 to 12 पोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट? दीज पोर्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर द लैन, राइट? आपको लैन कनेक्शन के लिए हो सकते हैं, और कुड बी वैन, राइट? SWAN means कि आपको अगर ISP की सर्किट टर्मिनेट करनी है, so you can do the termination on the ISP circuit on this particular port, and you want to connect this port on the switch, LAN switch, right? You can do that. So these all 12 ports can be used for the LAN and WAN. अब इसमें देखो, इसमें RJ45 के हैं, कुछ फाइबर्स के हैं। So it's totally depend कि आपका कितने स्पीड के कनेक्शंस हैं LAN में और WAN में, उस हिसाब से अपने डिफरेंट RJ45 और फाइबर बेस SFP भी आप यूज कर सकते हो। So it's completely up to you. तो ठीक है, तो जो भी हमारे पोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस ऑल आर फॉर द लैन एंड वैन कनेक्टिविटी। बट यहाँ पे आपको एडिशनल पोर्ट्स दिख रहे हैं, राइट? सो ये HA पोर्ट हम क्यों यूज करते हैं? दीज HA पोर्ट्स बेसिकली हाई एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं जब हमें दो फायरवॉल्स को आपस में HA में कनेक्ट करना है, राइट? सो HA कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर एक फायरवॉल मेरी डेड हो जाए या डाउन हो जाए तो दूसरी विल टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में क्या होता है, जो हम आगे इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लैब भी करेंगे और इसके बारे में पढ़ाई भी करेंगे, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये HA में पूरे डेटा को, पूरी कॉन्फ़िगरेशन को आपस में सिंक करते हैं, एंड देन फायरवॉल विल ऑटोमेटिकली फेल ओवर एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन इज गोइंग टू हैपन। मतलब इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं। आपका वैन डाउन हो गया तो भी फेल ओवर हो जाएगा, कोई लिंक डाउन हो गया तो भी फेल ओवर हो जाएगा, कोई पाथ डाउन हो गया तो भी फेल ओवर हो जाएगा, कोई फायरवॉल डाउन हो जाएगी तो भी फेल ओवर हो जाएगा। जो मैं आप लोग एक एक करके सारा सिनेरियो समझाऊंगा जब हम HA पढ़ेंगे। तो दिस पोर्ट आर फॉर द HA, हाई एबिलिटी फॉर द बिटवीन द टू पेयर ऑफ द फायरवॉल्स, राइट? इसी तरीके से हमारे पास अब यहाँ पे एक कंसोल केबल है, एक मैनेजमेंट पोर्ट्स हैं। तो जो कंसोल केबल होता है, जैसे आप स्विच में होता है, आप लोग देखा होगा, या कोई राउटर में होता है, सेम कंसोल का मतलब यही होता है कि अगर इस पर्टिकुलर फायरवॉल का, इफ यू वांट टू टेक द CLI एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फायरवॉल, राइट? तो जब भी आपको CLI एक्सेस लेना है, तो इस CLI एक्सेस लेने के लिए यू जस्ट नीड द, मतलब आपको सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। सीरियल केबल से आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे इस पर्टिकुलर फायरवॉल को, एंड देन यू विल गेट द कंसोल एक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर फायरवॉल, राइट? सो आप CLI में, जैसे मैंने अभी क्या कर रखा, अभी तो हमारे पास सब कुछ वर्चुअली है, तो मैंने इस फायरवॉल का मैंने कंसोल ले रखा है। जैसे मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूं तो आई विल गेट द कंसोल ऑफ द फायरवॉल। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने इस फायरवॉल का कंसोल ले लिया है, राइट? सो ये कंसोल है फायरवॉल का, इसमें CLI एक्सेस बेस पे हम इसको कंसोल ले रहे हैं। सो दिस इज द कंसोल ऑफ द फायरवॉल। अब इससे हमारा CLI एक्सेस होता है। CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस। बट अगर इस फायरवॉल को, इफ यू वांट टू टेक द GUI एक्सेस, if you want to take the GUI access of this particular firewall, then what you have to do, you have to connect the RJ45 cables on this particular port, one side, another side of your laptop, दूसरे साइड अपने लैपटॉप के आपको दूसरा RJ45 कनेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आप इसके GUI एक्सेस ले सकते हो। जैसे अभी मैं लैब में आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या कर रखा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपकी ये पर्टिकुलर पालो अल्टो फायरवॉल है, यहाँ पे आपका PC है। तो इस PC को मैंने, इस PC के जो निक कार्ड है हमारा, निक कार्ड मींस जहाँ पे लैन केबल जहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, हर एक PC की अपना NIC कार्ड होता है, उस NIC कार्ड से मैं पालो अल्टो के मैनेजमेंट पोर्ट पे कनेक्ट किया है। देख रहे हो MGMT यहाँ लिखा हुआ है। तो MGMT दिखने का मतलब कि मैंने इस पर्टिकुलर PC को इस पोर्ट से एक केबल से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो होता क्या है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, ये वाला जो पोर्ट होता है, जब भी आप नया फायरवॉल खरीदोगे तो हार्ड कोडेड एक IP एड्रेस लिखी रहती है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के समय ही मिल जाएगा। इस सीरीज का एक IP एड्रेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है। जब भी आप खरीदोगे फायरवॉल और आपकी कंपनी बाय करेगी, सो यू नो नीड टू डिफाइन एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, एनी IP एड्रेस, आपको ऑलरेडी एक IP एड्रेस यहाँ पे रहता है। दिस इज द प्री डिफाइन IP एड्रेस, आप इसको लिख सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसी सीरीज का IP एड्रेस अपने लैपटॉप पे दे दो। तो मान के चलो कि 192.168.1.2 मैंने यहाँ दे दिया /24 का। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, यहाँ पे 1 है, तो बीच में हमने लैन RJ45 Cat5 Cat6 केबल जो होते हैं उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं यहाँ CMD से इसको पिंग करूंगा तो बट नेचुरली इसको पिंग होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ जो फिजिकल फायरवॉल्स होती है, कई बार वर्चुअल फायरवॉल में ये IP नहीं होती है, तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर एनी IP एड्रेस, जैसे मैं भी दिखाऊंगा आपको। बट जब भी आप
ब्रांड न्यू फायरवॉल खरीदोगे तो दिस आईपी इज गोइंग टू बी गेट ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर जीयूआई एक्सेस, एंड दिस यूज फॉर द जीयूआई एक्सेस, इसको हम यूज करते हैं जीयूआई, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। और इसको हम बोलते हैं हमेशा CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। सो ये दोनों में फर्क होता है, तो CLI भी ले सकते हैं, GUI भी ले सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट पोर्ट वी हैव, हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्ट है दैट इज द USB पोर्ट। सो इफ यू सर वांट ये टू, मैनेजमेंट पोर्ट चेंज हो सकता है आईपी एड्रेस या डिफॉल्ट ही रहेगा वो 192? ये आप बाय डिफॉल्ट जब भी ब्रांड न्यू फाइल खरीदोगे तो आपको इनिशियली यही मिलेगा, बट इफ यू वांट आप चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। ये हार्ड कोडेड आएगा मैन्युफैक्चरिंग के समय से, लेकिन इफ यू वांट टू चेंज आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसकी, ठीक है सर जी। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे यूएसबी पोर्ट हमारे पास है। तो यूएसबी पोर्ट क्या है, जिसमें हम यूएसबी स्टिक लगा सकते हैं, राइट। यूएसबी स्टिक से हम क्या कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ फाइल हम कॉपी कर सकते हैं, कुछ हम लाइसेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइसेंस आपको मैनुअली अपलोड करना है किसी तरह का तो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारा यूएसबी पोर्ट से हम, मतलब जो नॉर्मल हम राउटर से करते हैं वही काम हम इसमें यूज कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट भी रहता है। अब एक इस पे एक दूसरा कंसोल है दैट इज सी टाइप कनेक्शन, अगर मान के चलो आपको सीरियल केबल नहीं है, RJ45 टू सीरियल कन्वर्टर नहीं है, तो आप सी टाइप आजकल कंसोल केबल आते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी CLI के लिए यूज होता है, दोनों का काम सेम होता है, तो आप इसको यूज करो या इसको यूज करो। यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए मिल जाती है कि हमारे पास दो तरह के कंसोल ऑप्शन हैं। तो जिसके पास जो फील्ड इंजीनियर होते हैं, कई बार उनके पास सी टाइप्स कनेक्टर होते हैं, कई बार उनके कंसोल होते हैं, दोनों होते हैं, तो दे कैन यूज वट एवर फील दे बेस्ट, ठीक है। तो ये कंसोल पोर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर PA80 मॉडल के ऊपर या किसी और भी फायरवॉल के मॉडल के ऊपर जो हम आगे बात करेंगे, हमारे पास अलग अलग LED के स्टेटस होते हैं। यू कैन सी हियर हमारे पास पावर, PW इज पावर, फैंस, अलार्म्स, स्टेटस, HA एंड टेम्परेचर। सो इनका मतलब क्या होता है, इनके 3 कलर हो सकते हैं, या तो ये ग्रीन होंगे, या तो एम्बर होंगे, या तो रेड होंगे, ठीक है। सो अगर ये सब कुछ ग्रीन है, सारा LED ग्रीन है, मतलब आपका डिवाइस बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है, यू नो नीड टू टेक एनी टेंशन, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट अगर एम्बर आया है, कुछ कलर इसका, कुछ LED का कलर एम्बर आ गया किसी रीजन से, तो बेसिकली देयर इज समथिंग इशू, नॉट वेरी सीरियस बट यस देयर इज सम इशू, राइट। आपका कुछ माइनर कुछ अलर्ट है, आप उसको ठीक कर लो, वरना इट इज गोइंग टू बी क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू। सो ये आपको उस समय थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा कि देयर इज अ वार्निंग, एम्बर मीन्स वार्निंग कि आपको कुछ एक्शन लेना है। बट अगर इट्स बिकम अ रेड, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स अ वेरी सीरियस, राइट। सो यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। सो आपको इस कलर का कोडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब जैसे आप कभी भी आप नॉक या सॉक में काम करते हो, तो आप रिमोटली होते हो, आप डिवाइस के सामने नहीं होते हो। तो जो भी इंजीनियर्स होते हैं, नॉक सॉक इंजीनियर जो भी होते हैं, तो जब प्रॉब्लम आती है कि फायरवॉल सही से काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, तो दे टू लाइक सम काइंड ऑफ R&D, मतलब बैठा बैठा कुछ आइडिया देते हैं कि बॉस आपको बताओ कैसा चल रहा है, मतलब वहाँ पे फैंस का क्या LED है, आपका HA का क्या LEDs है, पावर सप्लाई कैसी है, टेम्परेचर ऑफ द फायरवॉल कैसी है। तो आप LEDs की जब स्टेटस आपको पता हो तो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। तो ये एक तरह से ओवरव्यू होता है फायरवॉल टू फायरवॉल का, जो आप लोग को पता होना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग खोल खोल के, जैसे मैंने डायग्राम देखा है, ऐसी बहुत सारी फायरवॉल की सीरीज होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे सबसे छोटा सीरीज फायरवॉल आपका PA220 होता है, फिर आपका यहाँ पे PA420 भी मिल जाएगा आपको, PA आपका A20 में जैसे आपको दिखा रहा है वो मिल जाएगा, फिर आपका PA आपका 3220 मिल जाएगा आपको, राइट। इस तरीके से आपका 5000 मिल जाएगा, आपका 7000 मिल जाएगा, जो हायर एंड के फायरवॉल्स होते हैं। तो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, बट ओवरऑल जो आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, राइट, बैकलिन कैपेसिटी आपको ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जैसे हैं LED स्टेटस, कंसोल मैनेजमेंट, HA, ये सारी चीजें आपको प्रीडिफाइन आपको मिलेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड स्लाइड इन द फायरवॉल्स? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो आई एम कंसिडरिंग नो, फिर भी आप लोग पूछ लेना जब आपको समझ में ना आए।
सो व्हाट नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज कि अब हमारे पास एक ब्रांड न्यू फायरवॉल है, राइट। और मैंने क्या बताया कि जब भी आपको ब्रांड न्यू फायरवॉल मिले, अभी इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आपको करना क्या है, आप फायरवॉल को जब भी स्टार्ट करोगे तो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, राइट। सो आपको यूजर नेम पासवर्ड जब पूछेगा तो पहली बात, जब भी फायरवॉल आप स्टार्ट करोगे तो आपको इसको वेट करना मिनिमम 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स आपको वेट करना है, राइट। स्टार्ट करेंगे क्योंकि फायरवॉल के जो डीमंस होते हैं दे नीड टू सिंक अप, तो उनको टाइम लगता है, इनकी इमेज बहुत बड़ी होती है। जैसे एसडीवन के डिवाइसेस आप ऑन करते हो तो दे नीड 10 to 15 मिनट टाइम कि वो पूरा प्रोसेस को सिंक करते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो इनके बहुत सारे डीमंस होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो एक एक करके वो स्टार्ट होते हैं, टाइम लगता है उनको सिंक होने में। तो 10 से 15 मिनट आप वेट करो, चालू करके छोड़ दो, जब भी लैब करना 10 मिनट पहले चालू कर लो लैब को, आप छोड़ दो उसको। जब पूरा आपका बूट होके एडमिन यूजर नेम पासवर्ड का आ जाएगा तो भी आपको एरर थ्रो करेगा, जल्दी आप करोगे तो आप वेट करो 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट वेट करो। फिर आप यूजर नेम डालना है एडमिन, ठीक है। तो आपको यूजर नेम डालना है क्या, यूजर नेम आपका हो गया एडमिन, राइट। और आपका पासवर्ड जो हो गया वो आपको डालना है एडमिन। तो जब ये एडमिन एडमिन डालोगे तो आपको ये पूछेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो फिर से आपको रिपीट करना है, ओल्ड पासवर्ड ही पूछेगा। तो जैसे मैं बता रहा था मदन जी को, तो आपको फिर से डालना है एडमिन, फिर से आपको न्यू पासवर्ड के लिए पूछेगा आपके, तो आपको फिर से आपको यहाँ पे आपका जो भी नाम है, जैसे मैंने बताया था मदन जी का नाम है तो मदन 1 2 ये सब डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ले लेता है इसी फॉर्मेट में डालना। और फिर से कंफर्म पासवर्ड से आपसे पूछेगा, सो आप इसमें फिर से आप वही आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, जैसे मेरे पास अभी मिला हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरी जो फायरवॉल है उस पर मैनेजमेंट आईपी है कि नहीं है, कौन सी आईपी होनी चाहिए। क्या मैंने बताया था कि कोई भी मैन्युफैक्चर फायरवॉल होती है, सो बाय डिफॉल्ट इट्स हैव द आईपी एड्रेस 192.168.1.1/24। बट मैं कैसे चेक करूंगा कि ये आईपी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, अगर मैंने कंसोल ले लिया फायरवॉल की तो तभी मैं कंसोल ले रखा हूँ, CLI अभी ले रखा हूँ, जीआई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जाके अपने फायरवॉल पे जस्ट यू हैव टू गो इन द फायरवॉल, कमांड चलानी है, सो सिस्टम इन्फो, आपको कमांड चलानी है सो सिस्टम इन्फो। जैसे ही आप कमांड चलाओगे तो आपको इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे जो वर्चुअल इमेजेस होती है ना, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस अननोन दे रखा है, देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस अननोन दे रखा है, कुछ आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मतलब मैं जो बताया वो गलत हो गया। बट इट्स अ नॉर्मल, आप जब फिजिकल फायरवॉल खरीदोगे तो हार्डवेयर आईपी मिलेगी, लेकिन वीएम में जरूरी नहीं है कि ये मिले, वीएम में आपको मैनुअली डालना पड़ता है। जो भी अभी हम वर्चुअल में है तो आपके पास कोई आईपी नहीं है, तो जब आईपी नहीं है तो आपको आईपी डालना पड़ेगा मैनुअली, कोई भी आईपी डालो, जो आईपी यहाँ डालोगे वही आपके पीसी की आईपी होनी चाहिए। तो चलो हम लोग बाय डिफॉल्ट ही आईपी यही यूज कर लेते हैं। बट एक चीज देखो, जब मैं इस पे आईपी डालूंगा तो आईपी ये लेगा नहीं। अब क्यों नहीं लेगा उसके पीछे भी रीजन समझो आप लोग, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे आईपी नहीं है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। सो आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई आईपी नहीं है, यहाँ पे अभी फिलहाल आईपी एड्रेस अननोन, और यहाँ पे नेट मास्क इज अननोन, गेटवे भी सब कुछ अननोन है यहाँ पे। सो मैं आईपी कैसे डालते हैं फायरवॉल पे देखो आप लोग। तो जब भी कोई आईपी डालना हो फायरवॉल पे तो आपको करना क्या है, देखो अभी हम इनेबल मोड में है, राइट। सो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। जैसे आप सिस्को के राउटर स्विच पे जाते हो, सिमिलर वे यू जस्ट हैव टू गो इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड, सो यू जस्ट हैव टू टाइप कॉन्फ़िगर एंड प्रेस एंटर। नाउ यू आर इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड, देखो एंटरिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब आईपी देने के लिए क्या कमांड होता है CLI में, तो ये कमांड आप लोग लिख लो, क्योंकि कभी इनिशियल फायरवॉल कॉन्फ़िगर करोगे ब्रांड न्यू तो इस कमांड की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो यू जस्ट हैव टू राइट सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड नेट मास्क 255.255.255.0। अगर कोई डिफॉल्ट गेटवे तो डाल सकते हो, हमारे केस में भी डिफॉल्ट गेटवे नहीं है कुछ भी। सो हमें सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में डालना है सिर्फ। तो मैंने सिर्फ एक कमांड लिखा और ये मैंने डाल दिया। अब इस डालने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं होगी, ये आपने कॉन्फ़िग तो किया है बट ये कॉन्फ़िग अभी भी राइट नहीं हुई है। तो इसको राइट करने के लिए आपको एक स्पेशल कमांड चलाना पड़ेगा। अगर सिस्को राउटर होता सो वंस यू डिड द कॉन्फ़िगरेशन, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट गोइंग टू बी राइट इन द
जो भी उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन राइट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन अभी कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन है। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि ये अनसेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको सेव करने के लिए आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा यहाँ पे, द कमांड नो कमिट। हाँ, तो आपको यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगा कमिट। तो यहाँ पे लिखो जाकर कमिट। जब आप इसको कमिट करोगे तभी कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। तो मैंने इसको कमिट कर दिया। तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, ऑलमोस्ट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देन दिस इज गोइंग टू बी कमिटेड इन द फायरवॉल। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए सर। सर जैसे कि ये तो वर्चुअल है, अगर हार्डवेयर अप्लायंस हुआ और हमें डायरेक्ट आईएसपी से नेटवर्क देना है हमें अपने पीसी पे, तो उसके लिए सर हम आईएसपी का जो मतलब जो राउटर पे हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है उस वे में इसका ये आईपी देना होगा, या फिर हम अपने से कुछ भी दे सकते हैं? एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपकी टोपोलॉजी को ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसे समझ नहीं आया। जैसे ये पालो अल्टो फायरवॉल आप ये बता रहे हैं, राइट? जी सर, इससे पहले राउटर होता है, स्विच होता है। अच्छा, इससे पहले एक राउटर है, राइट? जी सर। और अब हमें इससे फायरवॉल आईएसपी कनेक्टेड है, ठीक है? हाँ ठीक है, आप बताइए। अब फायरवॉल में, इस फायरवॉल में तो सर 192.168.1.1 का ये है सर आईपी एड्रेस है। नहीं, आप देखिए राउटर जो है आप इसको किस इंटरफेस पे कनेक्ट कर रही है मैटर करेगा ना। देखिए फायरवॉल के कई तरह के इंटरफेस होते हैं। एक आपका इथरनेट 0x0 होगा, एक हो सकता है इथरनेट 0x1 हो, एक हो सकता है कि मैनेजमेंट हो। हाँ। तो आप किस इंटरफेस पे कनेक्ट कर रहे हैं आप सर राउटर को? मैनेजमेंट पोर्ट पे तो हम तो उससे ये लेंगे ना, अपने पीसी का कनेक्शन लेंगे। और तो इसको पीसी कनेक्शन किससे लेंगे? इस राउटर से लेंगे नो आप? सर, बेसिकली हम सर फायरवॉल और वैन नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। वैन नेटवर्क फायरवॉल के हाँ, तो वैन नेटवर्क कनेक्ट, तो आप पीसी का कनेक्शन आप इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट पोर्ट से लेंगे ना, यहाँ से। ये आपका पीसी हुआ, तो इसको मैनेजमेंट आपका राउटर हमेशा, तो ये मैंने बताया क्या, लैन जो आपके फायरवॉल जो होती है, सो द फायरवॉल व्हाटएवर द फायरवॉल वी हैव, ठीक है, उस पे हम लैन और वैन किस पे कनेक्ट करते हैं? हम इन पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लैन वैन के लिए होते हैं। मैनेजमेंट पे तो सिर्फ हम अपने उसका मतलब जियो एक्सेस लेने के लिए लोकली हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, या फिर इसको हम आईपी जो देंगे उसको रिमोटली रीचेबल कराकर फिर हमको रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं इस आईपी के थ्रू। तो आपका राउटर हमेशा इस पे कनेक्ट होगा। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अब जो राउटर से नेटवर्क आ रहा है, तो हमें सर उस डिवाइस का नेटवर्क इसमें देना होगा, या हम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं इस पे फायरवॉल पे? नहीं देखिए, आपका जो राउटर है, राइट, उसका जो आईएसपी का आईपी होगा, आईएसपी का आईपी बट नेचुरली कोई दूसरा होगा। ये इस पे आपका पब्लिक आईपी एड्रेस होगा या कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। इसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये आईपी एड्रेस से आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं उस पे आप इस तरह ना पिंग कर सकते हो, ना उस पे इस तरह का आप HTTPS कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस को आप पिंग भी कर सकते हो, इसको HTTPS भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि आपके पास सिर्फ एक ही गेटवे है जिससे आप जियो एक्सेस ले सकते हो, वो मैनेजमेंट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट। बाकी सारे इंटरफेस पे आपका सब कुछ डिनाय है। तो आप इसको अगर कनेक्ट भी कर देंगे तो आप इससे कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। समझा निकेत जी? जी सर, वही क्वेश्चन था सर। तो उसके लिए क्या करना होगा सर हमें करना, मतलब इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोफाइल एक लगानी पड़ती है, कैसे होता है, कैसे उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे कि जस्ट टाइम में कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कि आपको अपना फायरवॉल पालो अल्टो का डेमो देना है, ठीक है सर? तो हमारे आगे में FortiGate का फायरवॉल होता है, लगा हुआ रहता है। हमें ये शो करना पड़ता है कि आपका जो नेटवर्क है वो हमारे फायरवॉल से होके जा रहा है। तो उस पे हम तो कुछ सिक्योरिटी लगाते नहीं है फायरवॉल के नेटवर्क पे, अपने पालो अल्टो वाले पे। तो जो भी काम कर रहा है उनका FortiNet का काम कर रहा है, तो हम उसको एक सिंपल से टैप मोड पे रख देते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब इसके स्पेशल मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल इसके डिजाइन है। ठीक है, इसमें वी वायर मोड है, टैप मोड है, आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है। तो आपके बेस्ड ऑन द नीड आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा अगर बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर इस पे आईपी किस रेंज का देंगे, मतलब कि वो फायरवॉल से जो या राउटर से आ रही है उस रेंज का देंगे, या अपने मन से कुछ भी प्री डिफाइंड आईपी डाल सकते हैं? मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपको इस रेंज की आईपी देने की जरूरत नहीं है। ये अगर बाय डिफॉल्ट आपको एक मिनट मैनेजमेंट इंटरफेस बता रहा हूँ, पहले फिर लाइन बताते हैं। मैनेजमेंट इंटरफेस की जो आईपी होती है, ये आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट या तो 192.168.1.1 आप उसको यूज कर लो, या अपने हिसाब से कोई भी आईपी देकर उसको आप एक्सेस कर सकते हो, सेम पीसी और सेम का तक। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया मैनेजमेंट वाला? जी सर।
हाँ, इसका कोई वैन से लेना देना नहीं है। अब आपका तीसरा कनेक्शन आता है लैन, ठीक है। यस यस तो लैन वैन जो आपका कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन इज ऑलवेज फॉर द पब्लिक। आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको कौन सा आईपी यूज होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ना यहाँ पे यूज। जी तो सर पब्लिक आईपी एड्रेस आप लैन में तो यूज नहीं करोगे, व्हाट यू यूज, यू हैव टू यूज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे लैन में जितने पीसी होंगे, तो आप इसमें हो सकता है कि 172.16 आप यहाँ पे 10.10 का यूज कर लो /24 का, या आप यहाँ पे इस तरीके का यूज कर लो 10.10 का आप यूज कर लो, ठीक है, जी सर /24 का, या आप 192.168.10.0/20। तो ये सब आप लैन में यूज कर सकते हो। तो ये सीरीज का आईपी आपका जो लैन का आर्किटेक्चर डिजाइन करने वाला होगा, ही इज गोइंग टू टेल। बट ये आईपी एड्रेस जब यहाँ से लैन से लेकर फायरवॉल से बाहर जाएंगे, तो ये नैट हो जाएंगे किस पे, आपके पब्लिक आईपी एड्रेस पे, यस जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस Yeah. तरीके से आपका लैन टू वैन ट्रैफिक जाएगा, क्लियर। जी सर और मैनेजमेंट आपका हमेशा सेपरेट रहेगा। हाँ, आप चाहते हो कि मेरा मैनेजमेंट भी लैन के सेगमेंट में रहे, तो आप ये कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो कि मेरा लैन और मैनेजमेंट दोनों एक ही सबनेट में रहे, तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, राइट, और आप ये भी चाहते हो कि मेरा, एक मिनट, मेरा जो मैनेजमेंट इंटरफेस हो वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस, तो वो भी कर सकते हो। आपको बस खरीदना ही तो आईपी, और क्या करना है, इसको आईपी दे दो, पब्लिक आईपी एड्रेस रिचेबल हो जाएगा, बाहर से एक्सेस हो जाएगा ये, और आपका लैपटॉप से एक्सेस हो जाएगा। तो ऑल सिनारियो में यू कैन डू दैट, बट ऐसा हम करते नहीं है। जो बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्रीज का है कि हम मैनेजमेंट को लैन के आईपी एड्रेस से साइन करते हैं, दैट इज रिकमेंडेड, और वैन को हमेशा हम यूज करते हैं फॉर द गोइंग आउट फ्रॉम द आवर लैन नेटवर्क। सर इसी सिनेरियो में फायरवॉल को लॉगिन करने के लिए कैसे लॉगिन कर सकते हैं ग्लोबली, या नहीं हो सकता? ग्लोबली हो सकता है ना, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मैनेजमेंट आईपी जो होगी ना, इसको आप रिचुअल करा दो थ्रू आपका जो भी इंटरनल जो वैन सर्किट्स हैं उसके थ्रू। मैनेजमेंट आईपी को नेट नेट के थ्रू देना हाँ, पड़ेगा? रिचुअल करा दो, नेट के थ्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी बताइए। क्या इसमें एक ही ऑप्शन है केवल मैनेजमेंट पोर्ट? अगर मैनेजमेंट पोर्ट अगर खराब मतलब फॉल्ट हो गया, अब लोकल साइट पे अगर कोई बंदा, रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैनेजमेंट पोर्ट से कुछ इशू के कारण उसको हम टेक ओवर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ वैन कनेक्टिविटी से कहीं हाँ अदर साइड से, क्या अदर कोई दूसरा रास्ता है कि हम यस, हमारे पास सारे रास्ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सके, कुछ भी अदर थिंग? हाँ, ये अगर इफ यू वांट टू यूज दीज पोर्ट्स, कि आपको अगर इन पोर्ट्स को भी आप यूज करना चाहते हो कि मैं सेम तरीके से एक्सेस कर लूं, तो आप इनको भी कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस पे जो फीचर्स होते हैं इस पे इनेबल नहीं होते हैं, आपको इस पे इनेबल करने पड़ेगा CLI कमांड के थ्रू, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। मतलब मेरा मतलब था पॉसिबल है। आपके पास अगर कंसोल है फायरवॉल का, तो आप पूरी फायरवॉल को CLI से कर सकते हो, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। बट आप पूरी फायरवॉल CLI से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि आप GUI से ही सिर्फ कर सकते हो। तो आप CLI जब कर सकते हो, तो ये जो इंटरफेस है इस पे आप IP कनेक्ट, जैसे इस पे कर रहे थे आप, सेम इसी तरह से कर लो। इस पे IP डाल दो और इस पे आप अपनी IP डाल दो दोनों पोर्ट्स पे। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, इस पे आपको एक मैनेजमेंट प्रोफाइल लगाना पड़ेगा, और उस मैनेजमेंट प्रोफाइल में आपको HTTPS आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा। बाय डिफॉल्ट ऐसे नहीं चलेगा, तो आपको कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ओके सर, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा जो पोर्ट आप स्विच वाले जिसमें राउटर कनेक्ट होगा, इसमें क्या GUI ओपन होगा या CLI ओपन होगा? GUI ओपन होगा। आप CLI भी कर सकते हो, GUI भी कर, दोनों ही ओपन हो जाएगा आपका। अच्छा, CLI करने के लिए आपको पट्टी, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, CLI करने के लिए आपको पट्टी आपके PC में इंस्टॉल है, तो आप जाके पट्टी सेक्शन में IP डाल दो, CLI हो जाए। बस आप यहाँ से पिंग कर लो पहले कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंटरफेस, बस ठीक है, सेम चीज हो जाएगा। और GUI करने के लिए पहले जो मैनेजमेंट का है उस पोर्ट जो भी उसमें फंक्शन है उसमें पहले इसको मैनेज करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। GUI का नहीं, पिंग आपको पिंग भी करने के लिए आपको जो फीचर इस पे हैं, जैसे होता क्या बताता हूँ। देखिए, जो मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस होता है ना, ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन में, कोई भी मैनेजमेंट इंटरफेस होता है तो बाय डिफॉल्ट इस पे क्या क्या इनेबल होता है। देखो, इस पे बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी जाके। इसे बाय डिफॉल्ट पिंग इनेबल होता है और HTTPS इनेबल होता है। तो पिंग से क्या होता है, इसको आप पिंग कर सकते हो। HTTPS से क्या कर सकते हो, इसको वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग। सो ये बाय डिफॉल्ट इस पे इनेबल होते हैं। और बाकी जितने पोर्ट है ना, इस पे पिंग भी डिसेबल होता है, पिंग ब्लॉक्ड होता है आपका, और आपका HTTPS भी ब्लॉक्ड होता है। तो ये अगर मान के चलो कि आपने यहाँ पे एक केबल कनेक्ट कर दिया, देखो आपने यहाँ पे एक केबल कनेक्ट कर दिया,
और यहाँ पे पीसी ले लिया, तो आपने इसको आईपी दे दिया, मान के चलो कि यहाँ पे आईपी आपने दे दिया जैसे यहाँ पे दे दिया 192.168.1.1 और अपने पीसी को दे दिया आईपी 192.168.1.2/24। आपने दो आईपी दे दिया। जब आईपी दे दिया आपने, सो व्हाट यू हैव टू टेक, सो आप इसको पिंग करने की कोशिश करोगे तो आपका पिंग होगा नहीं, पिंग ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पिंग ब्लॉक्ड है। तो आपको इस पे पिंग अलाउ करना पड़ेगा। आप फिर अगर इसको वेब ब्राउजर से जाकर आपके ब्राउजर में जाकर आप इसको HTTPS करोगे तो भी ब्लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू क्रिएट एक इस पे मैनेजमेंट प्रोफाइल होता है, MGMT प्रोफाइल। तो उस मैनेजमेंट प्रोफाइल में जाकर आपको HTTPS एंड पिंग को अलाउ करना पड़ेगा एंड अप्लाई टू जो भी आपके इथरनेट इंटरफेस है ना, इथरनेट इंटरफेस जिसको भी आप ले रहे हो, जैसे मान लो इथरनेट जो इसको अप्लाई करोगे तब जाके आपका पिंग भी होगा और फिर मैनेजमेंट इंटरफेस होगा। तो सारी चीजें करके दिखाऊंगा आगे ना, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है सत्यम जी? जी सर। हाँ ठीक है, सो लेट मी मूव फर्दर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तभी मैं कहा था यहाँ पे तो फायरवॉल था, तो मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद देखो एक चीज दिखाता हूँ, मैंने आईपी तो डाल दिया यहाँ पे, आप लोगों के सामने डाला, आप आईपी डाल दिया। एनीथिंग आईफोन, आई कैन सी आईफोन नेम हियर, मे आई नो द नेम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी, सॉरी। सो आप चैट पर ड्रॉप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं एक बार माइक सही करके। सो जब यहाँ पे मैंने देखा, सो यू कैन सी हियर देयर इज आईपी आई डिफाइन हियर, बट अगर मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट किया मैंने, शो सिस्टम इन्फो। जब मैं शो सिस्टम इन्फो यहाँ किया तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आईपी नहीं आया। वेरी इंटरेस्टिंग राइट, मैंने आईपी डाला बट दिस आईपी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। आप लोग देखो कॉन्फ़िगरेशन मेरी कमिट हो गई बट ये आईपी नहीं आया यहाँ पे। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी सरप्राइजिंग। इसके पीछे क्या रीजन है वो समझो आप लोग कि आईपी क्यों नहीं आया यहाँ पे। मैंने आईपी दे दिया, आईपी एड्रेस एंड सब डिफॉल्ट मास्क भी दे दिया। तो आईपी असाइनमेंट इसलिए नहीं हुआ कि जो असाइनमेंट का मेथड है यहाँ पे ऑलरेडी प्रीडिफाइंड DHCP है। तो ये जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे स्टैटिक, तब तक आप कोई भी आईपी डालोगे इट इज नॉट गोइंग टू टेक। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। अगर आपको DHCP बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट पे आप इनेबल है एंड यू आर ट्राइंग टू पुट स्टैटिक आईपी एड्रेस, वो लेगा ही नहीं, वो अप्लाई नहीं होगा। सो यू हैव टू चेंज दिस एज वेल। सो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, वो कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, लेकिन तब तक वो अप्लाई नहीं होगा जब तक इसको चेंज नहीं करोगे। तो जैसे ही मैं इसको स्टैटिक चेंज करूंगा, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ही ऐड हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, फिर से आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में और आपको अप एरो मार लो और यहाँ पे जो सिस्टम है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम, यहाँ पे लिखो टाइप और यहाँ पे टाइप में देखोगे तो यहाँ पे DHCP क्लाइंट इन स्टैटिक, तो हमें कर देना है यहाँ पे स्टैटिक बस। अब इसको यहाँ पे जैसे ही मैं कमिट करूंगा, अब इसके बाद आईपी ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट लेट्स वेट, लेट्स वेरीफाई क्या होता है क्या नहीं होता है। हेलो मयंक जी, हेलो टेक्निकल ट्रेडर, there is a question on the YouTube, sir, what is the form factor RU in the firewall? RU means rack unit होता है टेक्निकल ट्रेडर जी, सॉरी। तो मैं सही समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन, तो RU का मतलब होता है रैक यूनिट। सो फायरवॉल की हर एक अपनी रैक यूनिट्स होती हैं, कोई 2R रैक यूनिट का होता है, कोई 1 रैक यूनिट का होता है। तो आई थिंक आप यही पूछ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं। हेलो मयंक जी, बताइए कुछ क्वेश्चन है आपको तो। So let's see. So commit is done 100%, right? So फिर से मैं एग्जिट होता हूँ यहाँ से एंड दोबारा से मैं अगर चलाता हूँ सो सिस्टम इन्फो। सो देखो नाउ आई हैव अ फायरवॉल। So Kamal, the class will be finished around next 45 minutes probably, or at least 30 minutes.
ठीक है। So the IP you can see here, the IP address is 192.168, 1.1 is applied here, and net marks is आप लोग यहाँ देखो 255, 255, 255.0 और असाइनमेंट देखो स्टैटिक हो चुका। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल गया, राइट, यू गेट एवरीथिंग। आपको आईपी मिल गया, आपको नेट मास्क मिल गया, आपको आईपी असाइनमेंट का जो टाइप था वो भी चेंज हो गया। सो नाउ वी आर गुड। सो जो फायरवॉल पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वी हैव डन, राइट। अब हमारे पास आता है कनेक्टिविटी की बात। तो कनेक्टिविटी क्या बोलता है कि यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द फायरवॉल्स फ्रॉम द मैनेजमेंट इंटरफेस टू द पीसी। तो हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, वर्चुअली है, फिजिकली होगा तो आपको करना पड़ेगा। और इस पीसी पे भी आपको इसी सबनेट का आईपी देना पड़ेगा। देन यू हैव टू कनेक्ट द RJ45 केबल, Cat 5 Cat 6 जो भी है, Cat 6 इज लाइक लेटेस्ट वन, आप उसको कनेक्ट कर दो और यू जस्ट हैव टू पिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो अगर आप ये पिंग करते हो इट्स पिंग सक्सेसफुल, देन इट्स गुड। अगर पिंग नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब कनेक्टिविटी में केबल फॉल्टी है या आपने सही से कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं किया, तो यू जस्ट हैव टू ट्रबल शूट। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका केबल सही है और आपने केबल को मैनेजमेंट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है, उस इंटरफेस को आपने सही आईपी दिया, उसी सबनेट का आईपी आप पीसी पे ले लो, डेफिनेटली 100% इट इज गोइंग टू पिंग। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो नाउ कमिंग बैक टू द पीसी, तो पीसी पे आप लोग डबल क्लिक करोगे तो जैसे मैं अभी बंद कर देता हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करा तो मेरे को विंडो पीसी इस तरह से खुलेगा कुछ तरीके से। मैं इसको सिंपली जाकर ब्राउजर में खोल लूंगा, ठीक है। तो करना क्या है आप लोग को, सिंपली आपको जाना है इसके नेटवर्क पे, यहाँ पे इसके जाना है प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता है करना कैसे कैसे। फिर आपको जाना लोकल एरिया कनेक्शंस में जाना है आपको, कनेक्शन में जाने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है आपको यहाँ पे, राइट। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको IPv4 में जाना है और आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है। क्या देना है, मैंने क्या बताया था आपको, 192.168.1.24। सो सेम सीरीज का आईपी मैंने दिया है 192.168.1.2/24 और आप डिफॉल्ट गेटवे देना चाहो दो, नहीं देना चाहो नहीं दो, कोई मतलब, क्योंकि सेम ब्रॉडकास्ट है तो इट इज गोइंग टू पिंग। सो मैं अगर डिफॉल्ट गेटवे नहीं भी देता हूं तो मैं इसको बस सिर्फ क्लिक कर दूंगा, मेरा हो गया अभी यहाँ पे। फिर मेरी आईपी कैसे वेरीफाई करूंगा, सो मैं गया यहाँ सीएमडी में, सीएमडी में जाने के बाद यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग और यहाँ पे देखो आईपी यहाँ पे मिल गया, राइट। सो व्हाट नेक्स्ट, सो आई जस्ट हैव टू पिंग फ्रॉम दिस पीसी टू दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंटरफेस और दिस शुड बी पिंगेबल। जब तक ये पिंग नहीं होगा तब तक हम बाकी चीजें कर नहीं सकते हैं। तो पिंग करते हैं यहाँ से, पिंग 192.168.1.1, right, and you can see it is pingable. So my PC start talking to the firewall, it's confirmed, my PC start talking to the firewall and we are good safe. So what next, जब मेरा PC जब firewall से बात करने लगी तो अब मुझे जाना है क्या, अगला स्टेप, मुझे इसका GUI एक्सेस लेने के लिए अब मुझे CLI लेना है। तो CLI लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से लेना है तो आपको सिंपली पार्टी सेशन में जाओ, यहाँ पे खोलो और सॉरी My video is stopped actually. Your video just stopped. Yeah. Anyone else facing this No, issue? it might be an internet issue at your end. You can disconnect and reconnect the session. It's fine. For us, it is working fine. No, Okay, sir. thank We're working fine. Okay, thank you guys, thank you everyone, thank you Vishal sir. Right, so we just have to go there and just have to type 192.168.1.1, simple step, and you just have to put this enter. आप जैसे ही इसको करोगे थोड़े समय बाद पॉपअप आएगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक यस एंड आप यहाँ से एडमिन डालो और इसका पासवर्ड जो भी है आप उसको डालो और देखो आप फायरवॉल का CLI एक्सेस मिल गया। तो जो आपका अभी कंसोल एक्सेस था, अभी मैंने इसको रिमोटली पट्टी के थ्रू एक्सेस ले लिया फायरवॉल का। देखो यहाँ पे अब मेरा फायरवॉल का यहाँ पे एक्सेस मिल चुका है। देखो सेम चीज, अगर मैं यहाँ चलाता हूँ शो सिस्टम इन्फो तो मेरे को सारी चीजें वहां पे दिख रही है फिर से। बट दिस इज लाइक मैंने इसको मैनेजमेंट आईपी के थ्रू अपने पीसी से इसको मैंने लिया है एक्सेस, दिस इज CLI एक्सेस मैंने ले लिया। अब मुझे इसका GUI एक्सेस लेना है, सो हाउ कैन आई डू दैट। सो GUI एक्सेस लेने के लिए आपको HTTPS करना पड़ेगा। HTTPS का मतलब आपको ब्राउजर चाहिए, जैसे आप facebook.com खोलते हो, yahoo.com खोलते हो, cisco.com खोलते हो, कुछ भी खोलते हो। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर आपके पास है आप उसको खोल सकते हो। खोलने के बाद करना है कि आपको यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड टाइप क्या, HTTPS आपको यहाँ लिखना है :/ and then you just have to put the IP address 192.168.1.1. so आपको यहाँ जाके लिखना है, so 192.168.1.1, राइट। आपको प्रेस एंटर, जैसे एंटर करोगे the
PC is going to try to connect the firewall and देखो इसने कनेक्ट कर लिया, but you are getting the warning कि कुछ कनेक्शन प्राइवेट नहीं है, कुछ कनेक्शन सिक्योर नहीं है, नो नीड टू वरी, क्योंकि हम डेमो सिनेरियो में बैठे हुए हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है फुल्ली, राइट। सो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको सिर्फ जाना है एडवांस पे, आपको एडवांस पे क्लिक करना है, प्रोसीड विथ आईपी एड्रेस अनसेफ लिखा, उस पर क्लिक कर दो आप। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट फायरवॉल पालो अल्टो का डैशबोर्ड दिखेगा। दैट इज जब भी आपको येलो डैशबोर्ड दिखे कहीं पर भी, दो तरह के डैशबोर्ड हमारे पास है, एक आपको ग्रे कलर में मिलेगा, ग्रे ब्लू के कॉम्बिनेशन में मिलेगा, और आपको एक येलो कलर में मिलेगा। येलो कलर इज द वन ऑफ द लेटेस्ट पैन ओएस, दैट इज अ पैन ओएस 10। इससे पिछले जितने भी हमारे पास डैशबोर्ड थे वो सारे हमारे पास ग्रे और ब्लू के कलर में मिलेंगे शायद आपको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो आपको जाके यहाँ पे इस फायरवॉल का, पालो अल्टो का फायरवॉल सेम जो आपको फायरवॉल अपने CLI पे सेट किया है वही GUI पे डालना है आप, राइट। सो आपने यहाँ डाला और आपने एंटर कर दिया। सो देखो आपका पालो अल्टो नेटवर्क्स में ये लॉगिन होने लगा। सो मयंक जी पूछ रहे हैं कि इनको पैनोरमा में लॉगिन कर रहे हैं तो इनको CMC लॉगिन आ रहा है, व्हाट इज। सो मयंक, CMC लॉगिन इज द नॉर्मल प्रोसेस, राइट। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डालो, आपका लॉगिन हो जाएगा। CMS लॉगिन इज द नॉर्मल बिहेवियर, पैनोरमा में यही आता है लिखकर। जब भी आप बूट करते हो तो पैनोरमा लॉगिन में आपको CMS लॉगिन ही लिख कर आता है। आप यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही इंटर मारोगे तो आप वहां पे आपको आ जाएगा लॉगिन करने के लिए, या आप हमारी पैनोरमा क्लास ज्वाइन कर लेना, मैं आपको उसमें सिखा दूंगा कैसे होता है, राइट। बट इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। सो गाइस सी, सो हियर यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे, और राहुल विल कवर पैनोरमा, विल कवर, डोंट वरी, ओके, विल कवर, विल डिस्कस इन डिटेल। पैनोरमा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पालो अल्टो फायरवॉल्स, राइट। सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको डिटेल में, आगे मॉड्यूल में मिलेगा आपको, राइट। देखो पैनोरमा हमारा है मॉड्यूल का पार्ट, सो यू विल गेट इन द वेरी लेटर स्टेज पैनोरमा, राइट। सो 11th मॉड्यूल में देखेंगे हम लोग इसके बारे में। यस मोहित, यू हैव एनी क्वेश्चन, यू रेज योर हैंड, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहित जी, बताइए। सर मेरे थोड़े 2 डाउट हैं जो थोड़ा क्लियर करने थे। लाइक जैसे आपने बाय डिफॉल्ट आईपी मिलता है हमें 192.168.1.1, तो पहला डाउट तो ये लाइक यू आर दी ओनर ऑफ कंपनी ABC एंड आई एम दी ओनर ऑफ XYZ, ठीक है सर। तो हम दोनों ने मान लो ये पालो अल्टो फायरवॉल खरीदा, तो बाय दिस आईपी मतलब ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ABC वाला बंदा खोल रहा है या XYZ वाला बंदा खोल रहा है, अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस आईपी को यूज करते हैं। सी बाय डिफॉल्ट आईपी को हम यूज करते हैं, राइट। सो ये पहली बात कि आईपी एड्रेस आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है, पहली बात। तो ABC कंपनी का नेटवर्क अलग होगा, राइट, और XYZ का कंपनी का नेटवर्क अलग होगा। तो अगर इन दोनों का आपस में बात करना है तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात नहीं कर पाएंगे, पहली बात, राइट। सो फिर इनको चाहिए क्या, इंटरनेट चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो जब पब्लिक आईपी एड्रेस से बात करेंगे तो ये आईपी ट्रांसलेट हो जाएगा प्राइवेट टू पब्लिक पे। सो ये आईपी को ये नहीं समझ पाएगा और इसकी आईपी को ये नहीं समझ पाएगा। जब भी ये इससे बात करने जाएगा तो उसको लगेगा कि मैं तो पब्लिक आईपी से बात कर रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी लैन नेटवर्क होता है, लैन में ही मैनेजमेंट होता है हमारा, जो लैन में ही हमारा मैनेजमेंट का आईपी होता है। लेकिन जब इसे वैन में जाते हैं हम, तो हमेशा इसको नेट की जरूरत पड़ती है। नेट क्यों, कि आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस, यहाँ प्राइवेट आईपी एड्रेस है, so these IPs cannot be travel over the WANs। so अगर ABC कंपनी का लैन है और यहाँ पे XYZ का लैन है, राइट, या मैनेजमेंट है, ये MGMT है, या फिर इसका लैन मान लीजिए ये भी प्राइवेट है और ये इधर वैन से भी कनेक्टेड है, तो ये मान के चलिए वैन इंफ्रा है। तो अगर ये वाला नेटवर्क इससे बात करना चाहता है या आपका यूजर इस फायरवॉल को एक्सेस करेगा, तो सिर्फ उसके लिए विजिबल होगा आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये राउटेबल नहीं होगा। पहली बात ये हो गया कि प्राइवेट आईपी एड्रेस नेवर ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। दूसरी बात ये होती है कि ये आईपी एड्रेस मैन्युफैक्चर होकर आती है, टेम्परेरी आईपी एड्रेस होती है ये, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको रखो, ये सिर्फ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो, राइट, इफ यू आर गोइंग टू बाय एनी मोबाइल, सो फैक्ट्री डिफॉल्ट आपके कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ एप्स होते हैं जो हर यूजर्स के मोबाइल में मिलते हैं, वहीं वो चेंज नहीं होता है, बट आप अपने हिसाब से अपने एप्स को कस्टमाइज कर सकते हो।
अपने आईपीज को, अपने नेटवर्क को इसी तरीके से आप भी कस्टमाइज कर सकते हो। दिस इज द इनिशियल फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स आईपी एड्रेस, बट अगर आप सेम भी रखते हो, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट फॉर द नेटवर्क। आपका किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। ठीक है मोहित जी? तो से रिलेटेड था, थैंक यू सर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, मींस वो शायद आधा आंसर तो मुझे मिल ही गया कि लाइक हमारे हैकर्स होते हैं, अब उनको बाय डिफॉल्ट पता है कि ये आईपी बाय डिफॉल्ट इस पालो अल्टो के साथ आता ही है, ये इस पे जाके मतलब कुछ इनके पास ऐसा कुछ मेथोडोलॉजीज होती है कि ये इसको मतलब किसी भी कंपनी के फायरवॉल को हैक कर पाए बाय दिस आईपी और रिकमेंडेड अगेन आपको अभी पूरा आंसर मिल जाएगा। देखिए अब मैं हैकर हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये मेरा एक हैकर है यहाँ बैठा हुआ इंटरनेट पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है क्या है, ये एक तरीके से प्राइवेट आईपी एड्रेस है, राइट। बाय डिफॉल्ट क्या किसी भी तरीके से प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप इंटरनेट से रीच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पे राउटेबल ही आईपी एड्रेस नहीं है। दिस इज प्राइवेट आईपी एड्रेस इज नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट। समझ गए आप? तो जब राउटेबल नहीं है तो हैकर कैसे इस आईपी तक पहुंच सकता है? पहुंच ही नहीं सकता है, राइट। सो तो आपका यहीं पे मतलब ड्रॉप हो जाएगा पैकेट, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है मुझे? थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सो मूविंग नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्या मैं बता रहा था, हाँ, तो अभी मेरा फायरवॉल का ये लॉगिन हो गया डैशबोर्ड, सो यू कैन सी हियर, सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द पालो अल्टो फायरवॉल। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये जैसे ही आप पालो अल्टो फायरवॉल को लॉगिन करते हैं तो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलता है, आपको यहाँ डिवाइस नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट आईपी मिलता है, जो मैनेजमेंट आईपी मैंने यहाँ दिया है वही मैनेजमेंट आईपी मिल रहा है, फिर उसका नेट मास्क मिलता है, फिर इसमें आपका कुछ मैनेजमेंट जो आपका इंटरफेस है उसका मैक एड्रेस मिलता है, फिर आपका पालो डिवाइस का मॉडल मिलता है, फिर इसका सीरियल नंबर है, देखिए क्योंकि फायरवॉल लाइसेंस है तो इसका सीरियल नंबर भी आपको मिल रहा है, सीपीयू आईडी, यूआई आईडी जो इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिक होते हैं वो डिपेंड करते हैं, इसका वीएम लाइसेंस VM50 है इसका, और इसके पास एप्लीकेशन का लाइसेंस है, थ्रेड्स है, एंटीवायरस है, डिवाइस है, सब कुछ इसके पास, यूआरएल फिल्टरिंग, सारे लाइसेंस अवेलेबल है इसके पास, राइट। सो इस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं किस तरीके से फायरवॉल में आपने लॉगिन किया है। आपने अगर GUI में लॉगिन किया है, सो यू विल गेट द वेब, यहाँ पे वेब दिखेगा आपका, राइट। अगर आपने कंसोल से एक्सेस किया तो ये दिखेगा आपका, अगर आपने CLI पट्टी से लॉगिन किया है तो आपको ये दिखेगा, जबकि मैंने किया था ना पट्टी से लॉगिन अभी, तो वो इसका आईपी दिखा रहा है कि आप इस आईपी से, देखो मेरे कंप्यूटर का आईपी दिखा रहा है यहाँ से, ये वेब का मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, क्योंकि मैंने इस कंप्यूटर पर बैठकर जिसकी आईपी है क्या .2 आईपी एड्रेस है, मैंने एक्सेस किया तो मेरे सिस्टम के आईपी एड्रेस भी दिखा रहा है, और किस तरीके से मैंने वेब से भी लॉगिन किया है और मैंने CLI से भी लॉगिन किया है, तो दोनों मेथड ही मुझे दिखा रहे हैं, बट कंसोल का मेरा अलग से दिखा रहा है। कंसोल के लिए कोई आईपी नहीं डिटेक्ट होता है क्योंकि वो सीरियल केबल से कनेक्ट होता है हमेशा। तो तीनों मेथड से किस टाइम पे कितने समय के लिए सब लॉगिन किया गया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, राइट। और भी आपका कुछ सिस्टम लॉग्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो यहाँ पे मतलब क्या किस टाइम पे क्या आपका सिस्टम लॉक्स हुआ, किस टाइम पे आपने एडमिन HTTP वेब ब्राउजर से किया, वो सारी चीज आपको दिख रही है। फिर आपको यहाँ पे दो सिस्टम रिसोर्स दिख रहे हैं, एक आपका CPU है मैनेजमेंट प्लेन के लिए, एक आपका डेटा प्लेन के लिए। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर इन द पालो अल्टो फायरवॉल, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा कि एक डिवाइस में 2 CPU लगे हुए हैं अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए। जैसे आप राउटर खरीदते हो आप या स्विच खरीदते हो या कोई अदर वेंडर के फायरवॉल खरीदते हो तो आपको एक ही CPU मिलता है, वही CPU आपका डेटा प्लेन भी हैंडल करता है और वही CPU आपका कंट्रोल प्लेन भी हैंडल करता है। लेकिन पालो अल्टो फायरवॉल हैविंग अ यूनिक फीचर कि आपका मैनेजमेंट प्लेन का CPU अलग होता है और डेटा प्लेन का CPU अलग होता है। तो अगर आपका मैनेजमेंट प्लेन का CPU डाउन भी हो जाता है किस रीजन से, राइट, तो भी आपका डेटा प्लेन वर्किंग रहेगा, आपका वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका डेटा प्लेन का CPU डाउन हो गया तो मतलब आपका पूरी ट्रैफिक कनेक्टिविटी रुक जाएगी, बट आपका मैनेजमेंट CPU ऑन है तो आप उसको रिमोट एक्सेस ले सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड डिजाइन एंड आर्किटेक्चर फॉर द पालो अल्टो कि इस तरीके से इन्होंने दो तरीके से CPU को इन्होंने डिजाइन कर रखा है फॉर मैनेजमेंट एंड डेटा। तो ये हमारा एक डैशबोर्ड होता है, इसको हम कैसे कस्टमाइज करते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें होते हैं। विजगेट्स में जाओगे तो आप अलग अलग लॉग्स फीचर मैं एक एक करके बताऊंगा आगे जब हम इसके बारे में पूरी डिटेल बारे में पढ़ेंगे डैशबोर्ड के बारे में। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे कैसे हम इसके
ये मैं बता ही देता हूँ अभी, हमारे पास टाइम है तो, कि टॉप एप्लीकेशन देखना है तो आप कौन कौन से टॉप एप्लीकेशन, अभी आप लोगों को पता नहीं होगा एप्लीकेशन क्या होती है, तो आप यहाँ से इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे आपको टैब्स दिखते जाएंगे। देखो कोई डेटा नहीं है टॉप एप्लीकेशन में, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर इस तरीके से आप हाई रिस्क एप्लीकेशन देखोगे तभी कुछ भी हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है आपके पास, राइट। आप यहाँ पे जाकर एसीसी एप्लीकेशन कमांड सेंटर देखोगे तो उसका भी कोई डेटा नहीं है, इसके लिए अलग टैब है, बट यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर सिस्टम्स के इंटरफेस देखते हो तो देखो सारे इंटरफेस दिखा रहे हैं, बट कोई भी इंटरफेस अप नहीं है आपका। देखो यहाँ पे सारे डाउन पड़े हुए हैं। डाउन मतलब नॉट कन्फिगर, डाउन मतलब रेड होता है या तो ग्रीन होता है, ग्रेड आउट मीन्स कि ये कन्फिगर ही नहीं है अभी तक। तो इस तरीके सारे इंटरफेस आप देख सकते हो। फिर आपके पास हाई एबिलिटी, मतलब इस पे एचए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो नॉट इनेबल, तो भी देख सकते हो आप। फिर इस तरीके से आप इसमें लॉग्स यूजलेस नहीं है, लॉग हमारे थ्रेड लॉग, यूआरएल फिल्टरिंग, सब कुछ देख सकते हो। जो आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ से हटा दो, यहाँ से क्लिक करके इसको क्लिक कैंसिल करोगे तो क्लिक करोगे क्रॉस पे तो हट जाएगा। अगर आपको इसको इधर देखना है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, देख रहे हैं आप लोग। तो जो चीज अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना चाहते हो अपने हिसाब से डैशबोर्ड बना सकते हो कि जो आपको देखने में अच्छा लगे, जो चीज को जहां देखना चाहते हो वहां पे आप लगा सकते हो। सो डैशबोर्ड इज अ वेरी वेरी गुड फॉर द पालो ऑल्टो, कि आप यहाँ बैठकर आप पूरा कंप्लीट फायरवॉल को विजुलाइज कर सकते हो कि मेरे फायरवॉल पे क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। अब बात आती है कि जब हम मैनेजमेंट इंटरफेस तो कॉन्फ़िगर कर दिए थ्रू द सीएलआई, बट अगर मुझे जीयूआई में देखना है तो मैनेजमेंट इंटरफेस को मैं कैसे देख पाऊंगा, राइट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है डिवाइसेस में, इस डिवाइस पे क्लिक करना है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग। सो आपको यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करना है, तो आप डिवाइस पे जब भी आओगे तो यहाँ डिवाइस पे क्लिक करो। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक, तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक मैनेजमेंट दिख रहा है, राइट। बट आप इस मैनेजमेंट में आप जनरल सेटिंग्स देख सकते हैं, पैनोरामा सेटिंग्स देख सकते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन सेटिंग, डिवाइस सर्टिफिकेट देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे आईपी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जाना कहाँ है, आपको डिवाइस में आने के बाद सेटअप में जाने के बाद आपको इस इंटरफेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इंटरफेस लिखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस इंटरफेस। सो आप जैसे ही इंटरफेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लिखेगा मैनेजमेंट। सो दिस इज योर मैनेजमेंट इंटरफेस। एंड देखो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था, इस पे पिंग इनेबल होता है, एचटीटीपीएस इनेबल होता है, और एसएसएच बाय डिफॉल्ट इनेबल होता ही हो, टेलनेट ब्लॉक होता है। तो सारे आपका सर्विसेज है बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे इनेबल होते हैं। मतलब आप एसएसएच कर सकते हो फायरवॉल्स को, आप इसको एचटीटीपीएस कर सकते हो, आप पिंग कर सकते हो। और आपने जो सीएलआई से आईपी दिया वही आईपी आपको यहाँ दिख रहा है, बट आप यहाँ पे अगर आईपी चेंज करना चाहते हो, आपको मान के चलो हो गया, तो आप यहाँ पे आईपी चेंज कर सकते हो। देखो मैंने स्टैटिक किया था तो स्टैटिक दिखा रहा, पहले डीएससीपी क्लाइंट था पड़ा हुआ। अगर कोई सर्विस को आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं चाहता हूँ कि एचटीटीपीएस ब्लॉक हटा दूं तो यहाँ से हटा भी सकते हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप एचटीटीपीएस टेलनेट भी इनेबल करना चाहते हो, इनेबल कर सकते हो यहाँ से। HTTPS मीन्स सिक्योर, HTTP मीन्स नॉन सिक्योर, राइट। आप टेलनेट मीन्स कि मतलब ये भी नॉन सिक्योर है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं, बट आप इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आप SNMP करना चाहते हो, HTTP OC SP करना चाहते हो, यूजर आईडी करना, ये सब कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट 3 सर्विसेज आपको मैनेजमेंट इंटरफेस पे इनेबल होती है, जो कि होती है HTTPS, आपका SSH और आपका पिंग। यहाँ पे स्पीड एंड नेगोशिएशन ऑटो होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं सेट कर दूं हाफ डिप्लेक्स 1 GB 100 Mbps, तो ये सब भी कर सकते हो। MTU आप सेट करना चाहो तो भी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे कुछ सेटअप द आईपी एड्रेस हम वही एक्सेस कर पाए, तो उन आईपी एड्रेस को भी आप परमिट कर सकते हो। सारी आईपी एड्रेस ना एक्सेस कर पाए, मैं चाहता हूँ कि कुछ आईपी एड्रेस रेंज ही मेरे मैनेजमेंट मेरे फायरवॉल एक्सेस कर पाए, ताकि किसी तरह का कोई अननोन हैकिंग वगैरह जो लैन से भी कोई लोग करना चाहते हैं किसी तरह का आईपी स्नूपिंग करके, तो ना कर पाए, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। दिस इज द पॉसिबल। सो परमिट हम कर सकते हैं आईपी, कोई भी रेंज का आईपी हम परमिट कर सकते हैं, वाइट लिस्ट कर सकते हैं, जिससे तरीके से इससे हमारा एक्सेस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट इंटरफेस। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट इंटरफेस का फीचर क्या होता है, हाउ इट कैन बी हेल्प यू टू गेट द GUI एक्सेस ऑफ द फायरवॉल, राइट, एंड हाउ बेसिकली मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो डिफरेंट फीचर को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आईपी कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको डीएससीपी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एंड सर्विसेज बाय डिफॉल्ट कैसे इनेबल होती हैं। लेट मी नो इफ यू गाइस हैविंग एनी क्वेश्चन ऑन इट। सर हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए। Sir, how is the use the MTU and why is the use the MTU, sir? एक मिनट थोड़ा म्यूट कर लीजिए, जहां से भी आवाज आ रही है वहां से। हाँ आप बताइए थोड़ा सा।
सर ये MTU आपने बताया, MTU सर क्यों यूज होता है, किस लिए MTU का बेनिफिट्स, मतलब बहुत जगह पे यूज होता है, मैंने देखा है MTU का, बट उसका एक डिस्क्रिप्शन टाइप का थोड़ा बता दीजिए MTU का यूज। हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। सो MTU जो होता है बाय डिफॉल्ट, आपका MTU जो होता है हर एक जो फिजिकल इंटरफेस होते हैं, एक मिनट ना, 1500 होता है। सो बाय डिफॉल्ट हर एक इंटरफेस, जितने भी इंटरफेस होते हैं, राउटर स्विच जितने भी सब कुछ होते हैं, तो हर एक इंटरफेस का जो होता है बाय डिफॉल्ट आपका 1500 होता है। सो MTU इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है। MTU इज नोन एज ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कि ये दो PCs हैं या दो स्विच हैं, यहाँ से स्विच 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्विच 2 है आपका, इसके बीच में एक केबल कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे एक PC कनेक्टेड है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, राइट, PC ये बैठे हैं, और यहाँ पे एक PC यहाँ पे B बैठे हैं। अब बीच में तो केबल लगा हुआ है, राइट, दिस इज द RJ45 केबल, जिसको हम बोलते हैं लैन केबल, कुछ भी आप बोलो। तो इस PC ने कुछ पैकेट भेजा, राइट। अब इस पैकेट का साइज जो है, मान के चलो कि इसने भेजा पैकेट, वो साइज का है आपका 1700 बाइट्स का। हर एक पैकेज का बिट्स एंड बाइट्स का साइज होता है। तो क्या होगा कि इस इंटरफेस पे डिफॉल्ट MTU, मतलब इसका MTU सेट कर रखा है हमने 1500। तो क्या होगा, ये पैकेट जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो ये पैकेट इसकी कैपेसिटी से बड़ा होगा। मतलब इस तरीके समझो कि एक पाइप है यहाँ पे, ठीक है, और एक पाइप ये है। अब इस पाइप की कैपेसिटी है कि मैक्सिमम आपका 1500 लीटर को पर सेकेंड वाटर को कैरी कर सकता है, बट ये आपका 2000 लीटर सप्लाई कर सकता है। तो अगर यहाँ से वाटर बहुत ज्यादा तेज आ रहा है तो इस पानी में जाने की कोशिश करो तो यहाँ पे ओवरफ्लो होगा ना, या फिर आपको इस पानी को रोक रोक के भेजना पड़ेगा। आपको जो पानी बहुत तेज 20 लीटर प्रति सेकंड या जो भी प्रति मिनट आ रहा है, आपका पर मिनट आ रहा है, यू कैन नॉट सेंड ऑल वाटर इन दिस स्मॉल पाइप। तो आपका बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, स्टॉपर लगाना पड़ेगा, या फिर थोड़े समय के लिए आपका सप्लाई बंद करना पड़ेगा। देन इट इज गोज स्लोली एंड पास होगा, फिर आप दोबारा भेजो तब जाएगा, नहीं तो आपका वाटर वेस्ट होगा। सिमिलर वे में क्या होता है कि अगर आपने मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यहाँ सेव कर दिया तो मैक्सिमम पैकेट साइज कैन बी ट्रेबल ऑन द इंटरफेस इज 1500 बाइट्स। लेकिन अगर 1700 बाइट का भेजा तो वो पैकेट वो इंटरफेस को भेज नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, फ्रेगमेंट कर देता है। फ्रेगमेंट मीन्स कि इस पैकेट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। तो फिर छोटे पार्ट में हो जाएगा। तो अगर सपोज करो कि इस पैकेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 850 एंड 850 हो गया। तो आसानी से इस इंटरफेस से पास हो जाएगा। सो दिस इज द MTU। MTU अगर आपका कॉन्फ़िगर्ड है तो दैट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। कितना आप पैकेट भेज सकते हो, कितना बड़ा इस साइज का पैकेट आप भेज सकते हैं, ओके इसलिए सर, भेजा। अंडरस्टैंड। ओके सर, क्या MTU की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट 1500 है, ये चेंज मिनिमम मैक्सिमम इसका कुछ वो भी रहता है कि मतलब मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम यह बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1500 रहता है, आप इसको घटा सकते हो, बढ़ाने का इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, कि इंटरफेस की उतनी कैपेसिटी होते हैं इन राउटर स्विच एंड फायरवॉल सभी में सर ये बाय डिफॉल्ट इतनी रहता है $1500। बाय डिफॉल्ट जहां भी RJ45 कनेक्शंस लगते हैं या कोई भी फाइबर भी लगता है तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन 1500 साइज का ही लगता है। ओके सर, राइट, ऑल राइट, सो थैंक यू। So this is for the management. Any other question guys? Any other question? Because we have to move. I believe आज के लिए हम थोड़ा सा कम ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कल आप लोग आई होप कि एवरीवन विल ज्वाइन, क्योंकि विल स्टार्ट लाइक फ्रॉम सिंगल पास आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई मिस मत करना, राइट। नोबडी, आई रिकमेंड कि आप लोग मिस नहीं करना, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्चुअल सिंगल पास आर्किटेक्चर विद पैरेलल प्रोसेसिंग। जो आप लोग जब भी इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, ट्रस्ट मी, this is going to be asked the first questions if you are going to give the interview the Palo Alto Firewall, what is a single pass with the parallel processing architecture? And I must say कि हर एक इंजीनियर को जो Palo Alto जानता है, they should know कि इसका मतलब क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं। This is the key things of the Palo Alto, कि यही एक यूनिकनेस है Palo Alto के पास, जो एक सिंगल पास with parallel processing architecture, SP3 आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, सिंगल पास सॉफ्टवेयर विद पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं।
और दूसरा इसका यूनिक पैकेट फ्लो, राइट? दिस इज समथिंग आई कैन से कि यू शुड नो बीइंग एन इंजीनियर, राइट? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है, आई ऑलवेज से इन माई क्लास, जो भी मेरा लाइव सेशन होता है, कि हम जो क्लासेस है मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी बैच होता है आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पैकेट फ्लो, क्योंकि ये पैकेट फ्लो इतना पावरफुल है कि पूरी पालो अल्टो इसमें खबर हो जाती है। एक एक चीज, स्लो पाथ, फास्ट पाथ, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, कंटेंट आइडेंटिफिकेशन, सेशन कैसे बनता है, कैसे आपका एसएल इंस्पेक्शन होता है, कैसे आपकी नेट होता है, कहाँ पे नेट होता है, सोर्स नेट कैसे होता है, डेस्टिनेशन नेट कैसे होता है, मतलब जितना भी कोर्स कंटेंट है, दिस ऑल इज गोइंग टू कवर इन द पालो अल्टो फायरवॉल और दिस पैकेट फ्लो। और जब इसका हम डिबग करते हैं, जब इसका हम पैकेट कैप्चर करते हैं, तो एक एक चीज इसमें दिखता है सारे। So I can see the Rahul is asking, sir, Palo Alto SD-WAN configuration is possible. So Rahul, Palo Alto SD-WAN configuration is possible, but we need for license for that. ये मीन्स उसके लिए हमारा SASE का लाइसेंस होना चाहिए, जो हमारा प्रिज्मा एक्सेस है, तब हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट? इस मॉड्यूल में वी कैन नॉट डू दैट। मैं आपको फीचर बता सकता हूँ, बट वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर द Palo Alto Firewall in this particular module. फॉर SD-WAN हमारे पास जो अभी जो मोस्ट पॉपुलर SD-WAN है, दैट इज वर्सा एंड सिस्को, बोथ बैचेस वी आर रनिंग, क्योंकि सबसे Palo Alto इज नॉट too much in demand for the SD-WAN, but yes, SASE solution is too much in demand, enterprise firewall is too much demand. हर वेंडर का, हर हार्डवेयर का अपना लिमिटेशंस होता है और अपना मार्केट कैप होता है, राइट? सो आईफोन, अगर आप लोग अपना नाम लिख देंगे तो मेरे बड़ा अच्छा रहेगा, आईफोन बोलने की बजाय। आई नीड लाइसेंस फॉर द, सी Palo Alto फायरवॉल की लाइसेंस मैं अरेंज करा सकता हूँ, बट SD-WAN की आपको प्रिज्मा एक्सेस की लाइसेंस लेनी पड़ेगी, SASE सॉल्यूशन की, वो Palo Alto ही देता है। ओके संजय जी, थैंक यू सो मच। सो संजय जी, आपको प्रिज्मा एक्सेस का लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर द SD-WAN कवरिंग फॉर द ऑल, राइट? तो या फिर आपको Palo Alto की लाइसेंस लेके आप उसमें से कुछ फीचर एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज द ओनली वे। आपकी कंपनी में यूज हो रहा है क्या Palo Alto का SD-WAN? कैन अगर अनम्यूट करके आप बता दें तो थोड़ा हमें समझ में आ जाए। सो आई विल फिगर आउट द वे कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रेयर मैंने देखा है कि Palo Alto का SD-WAN कहीं पे यूज हो रहा है, क्योंकि इट्स No, I नॉट। was just answering the Rahul question. He was asking him, does Palo Alto support SD-WAN? So I, instead of the lead, I was Okay, just okay, answering. you helping the Rahul. Okay. Yes, Thank you, yes, I thank was you. just answering. Yeah, Okay. It need okay. yeah. Thank you so much. All right, any other question, guys, for today's session? Because I believe we are done for today, because it's very important and we understand each and every part. Now we connect tomorrow again and we'll start from the actual module. Yes, Kamal, बताइए। सर मैंने कई बार फिर से ट्राई किया, वो वर्चुअल मशीन में जो पोल्टोलो का वो पासवर्ड यूजर आईडी फिर से गलत ही बता रहा था। तो क्या मैं ये सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या आपको? हाँ आप करिए, एक मिनट मैं आपको अभी देता हूँ, एक मिनट आप स्क्रीन शेयर करिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं भी चेक करता हूँ आपका। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। यस प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर ये कहाँ से करना होगा? आपके अभी आपको मैंने वो बता दिया है कि आपको मैंने अभी एडमिन बना दिया है, तो आप अभी शेयर कर, वहाँ शेयर का बटन आ रहा होगा एक आपका। ओके शेयर, शेयर स्क्रीन का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए आप। रिकॉर्डिंग सर कहाँ पे? नीचे म्यूट, चैट, नीचे आपको हाँ शेयर स्क्रीन आ रहा होगा, एक क्लिक के ग्रीन बटन आ रही होगी, उस पे आपको। आया सर? अभी तक तो नहीं आया। सर एनी डिस्क ले लीजिए, हम लोग को भी दिख जाएगा। नहीं बहुत इजी होता है, पता नहीं मदन जी क्यों नहीं दे, मैं होस्ट बना रखा, बहुत इजी होता है इस पे शेयर करना, इसमें कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन कलर का, उस पे जैसे मैं करता हूँ वहाँ पे लिखा होस्ट डिसेबल पार्ट। सर एक्चुअली होस्ट इज डिसेबल। अब नहीं, मैंने होस्ट बना रखा। मदन जी बात कर, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मदन बोल। मदन आपको मैंने होस्ट बना रखा है, आपको मैंने होस्ट बना रखा है, एक मिनट रुकिए आप। रिक्लेम होस्ट मैं दोबारा बना रहा हूँ आपको, मैंने होस्ट बना रखा है क्योंकि मेरे पास होस्ट नहीं है, मैंने आपको दोबारा होस्ट बनाया, दोबारा चेक करिए आप ही होस्ट हैं। होस्ट डिसेबल, होस्ट डिसेबल अभी भी आ रहा है आपके पास?
जी। अच्छा एक मिनट, मैं किसी और को बना रहा हूँ दूसरा। एक मिनट वेट करिए सर। मुझे भी ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग ऐसा दिख रहा है। हाँ नहीं तो ठीक है, आपको मैं सत्यम होस्ट बनाया दोबारा से, आप चेक करो आप दोबारा। हाँ सर आपको अभी मैंने आ गया आ गया ना आपको। हाँ इनको बोलिए कि वो नीचे अगर ये स्क्रीन में सबसे, अगर मोबाइल से चालू है तो सबसे नीचे जाए, सबसे नीचे में दिया हुआ है स्क्रीन के लिए। अगर लैपटॉप पे ऐसा अपना रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे दिया होगा। एक मिनट दोबारा मदन जी आपको बना रहा हूँ होस्ट, आप होस्ट हैं अभी, आप दोबारा ट्राई करिए आप। हाँ क्योंकि ऐसा होता नहीं, बहुत इजी है, आपको बस क्लिक करना है, शेयर बटन का एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे में बस। हाँ उस पे होस्ट आपको मैंने बना रखा है। अच्छा एक काम करिए, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दीजिए मुझे, 1 to 1 पिंग करिए, मैं अभी देख लेता हूँ। मैं अभी यूजर नेम पासवर्ड मुझे 1 to 1 पिंग करिए आप मदन जी। जी। हाँ आप मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड 1 to 1 पिंग करिए, ठीक है। आप मुझे 1 to 1 यूजर नेम पासवर्ड पिंग करिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सिर्फ मुझे ही पिंग करिएगा, GuiNet लिख के आ रहा होगा उसको पिंग करिएगा आप, सबको पिंग मत करिएगा। चैट पे आप करिए पिंग। नहीं कर पा रहे हैं? नहीं तो सर मैंने उसमें मैसेज भी कर दिया सर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या? ओके ओके सो अभिषेक सर कैन यू जस्ट शेयर मी द यूजर नेम पासवर्ड, अगर आप हैं तो आपके पास गया तो। आप चैट नहीं कर पा रहे हैं क्या? ओके सर मैं कर रहा हूँ। चैट में मुझे आप कर सकते हैं। ओके सर मैंने सर आया क्या? एक मिनट। अच्छा आपका रैक नंबर क्या है? रैक नंबर बताइए मुझे, रैक नंबर जो है 8080 8080 है राइट? एक मिनट अभी मैं चेक करता हूँ आपका क्या इशू आ रहा है। 8080 है ना आपका रैक? 8080 ठीक है। मदन ये यूजर नेम आपका? जी मदन। पासवर्ड मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ। हो गया ठीक है। आपका ये पालो अल्टो फायरवॉल राइट? अब इसका इमेज क्या आपने यूज किया है मुझे नहीं पता है, बट लेट मी सी। ओके ठीक है। सो ये एडमिन डाला मैं यूजर नेम, ठीक है। ओके खो तो गया, देख तो रहे हैं, ये ले तो लिया यूजर नेम पासवर्ड, एडमिन डाला तो अब यहाँ पे वही तो बता रहा हूँ, इंटर ओल्ड पासवर्ड, फिर से एडमिन डालना आपको और पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखिए मैं क्या पासवर्ड डाल रहा हूँ, देखिए मदन जी थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये डाल रहा हूँ, देखिए पासवर्ड, ठीक है, नया पासवर्ड, ठीक है। देखिए MADAN 1 2 3, ठीक है, MADAN 1 2 3, ठीक है। हो गया, कितना इजी था, अब कुछ नहीं करना था। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, होता है कि नई बार में चीज होती है। देखो यहाँ पे जाके चलाना क्या आपको, सो सिस्टम इन्फो, देखिए चल गया, कोई आईपी नहीं है। अब आपको ये लैब करनी है आईपी साइन करके, ठीक है। यस सर डन, मैं लॉग आउट कर दूं? हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है जैसे बताया। और जो डिवाइस आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको बंद आप लैब करने के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बंद कर दिया करिएगा, नहीं तो क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स जो भी कलीग्स हैं उनको दिक्कत आती है लैब करने में, क्योंकि रिसोर्सेज किल होते हैं सर्वर्स के, जो भी हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं उनके रिसोर्सेज किल होते हैं। तो आप लोग लैब करिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना देर करना करिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको रात भर दिन भर करना करिए, लेकिन जब आपका काम हो जाए एंड यू फील कि ना मुझे सोना है राइट,
so you can just go and off all the labs. आप यहाँ जाकर simple stop all the labs. मैं वंदन जी का नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी करेंगे, so आप लोग कर सकते हैं। सर वो जो पाथ है ब्राउज का वो शेयर कर देंगे। हाँ, आप लोगों को सबको लैब एक्सेस मिलेगा, सबको लैब एक्सेस मिलेगा। एवरीवन विल गेट द लैब एक्सेस, सबको अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ओके तो ये कब मिलेगा? ये इस वीकेंड पे सबको मिल जाएगा। आफ्टर टुमारो क्लास एवरीवन विल गेट दैट, ठीक है। इस वीकेंड में सबको मिल जाएगा, या प्रॉब्लम मैं कल ही सबको अरेंज कराता हूँ, ठीक है। और लैब गाइड वगैरह भी सारों को सारा सब बनेगा? कुछ सब कुछ सब कुछ। ये फोल्डर देखिए, मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। जितना टी शूट का डॉक्यूमेंट्स हैं, देख रहे हैं आप लोग, CLI कमांड वगैरह सब कुछ जितना है इसमें, डीबग कमांड, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो भी मेरे पास हैं, दीज ऑल डॉक्यूमेंट विल गेट। जितनी मेरे पास ई बुक्स हैं, ठीक है, जो आप लोग पीपीटी जो है वो भी मिल जाएगा आप लोग को। पीपीटी जो है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यू विल गेट द एंटायर पीपीटी, ठीक है, आपको भी मिल जाएगा। जो भी ई बुक्स हैं वो सारी मिल जाएंगे आप लोग को। पैनोरमा, एडमिन पैन OS 9, 10, जो भी लेटेस्ट आपको पीसीएनए की लैब गाइड, स्टडी गाइड सब मिल जाएगा आपको, प्लेटफॉर्म डिटेल। और जो लैब गाइड, जो टफ लैब गाइड्स हैं, जैसे क्या क्या लैब गाइड आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके लैब गाइड डिफिकल्ट है, वो 2 ही लैब है ऐसी जो आप लोग डिफिकल्ट है। आप लोग जो बाकी बोलोगे मैं दे दूंगा और भी, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने से करो। लैब गाइड पे डिपेंडेंट मत रहो। ग्लोबल प्रोटेक्ट का लैब गाइड सबसे टफेस्ट है, तो इसकी प्रॉपर लैब गाइड बनी हुई है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, यूजर आईडी की हैं, VPNs की हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। बाकी जो सिंपल सिंपल लैब है आप लोग सीख जाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत की बात नहीं है, सब सीख जाओगे आप लोग। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप जैसे से बताऊंगा, जस्ट आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन लेके रखना और वीडियोस को एक बार देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट होती है, कई बार मैं बार बार चीजों को कराऊंगा, तो आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा कि नहीं ये चीज ऐसे ही होती है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स है उसके लैब गाइड मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग, एक फोल्डर मिलेगा उसमें सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, मोहित रावत जी पूछ रहे हैं कि सर कंपनी में अगर सॉक टीम मल्टीपल वेंडर फायरवॉल लोड बैलेंस सपोर्ट करती है तो एलिजिबिलिटी टू प्रोडक्ट है, देन पालो अल्टो के साथ कॉम्बिनेशन में चीज को करना सही रहेगा या पालो अल्टो? देखो मोहित जी, सिंपल लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इफ यू आर डूइंग पालो अल्टो एंड सैसी, सैसी का मतलब क्या है? सैसी का मतलब जी स्केलर सैसी, आपने जो लिख रखा है, अगर आप ये कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट में अगले 10 साल तक आपकी इतनी डिमांड रहेगी कि आप अगर इस पे एक्सपर्ट हो तो एवरीवन वांट कि मोहित जी मेरे साथ काम करें, ठीक है। ये सैसी की और फायरवॉल्स की आज के मार्केट में वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज डिमांड, सैसी तो फ्यूचर ही है, सैसी इज अ फ्यूचर। और सैसी तो मैं बोलता हूँ कि हर एक सिक्योरिटी इंजीनियर अगर है तो उसको मतलब सिक्योरिटी सीख कर सैसी में मूव होना ही चाहिए, जिस कलर मूव होना ही चाहिए, आपका नेट स्कोप में मूव होना ही चाहिए, पोलो अल्टो सैसी मूव होना ही चाहिए। तो पोलो अल्टो एक ऐसा है अभी मार्केट कैप जिस कलर का सबसे कॉम्पिटिटर है। तो अगर पोलो अल्टो का प्रोडक्ट आपने सीख लिया फायरवॉल को, तो पोलो अल्टो का सैसी तो आप ऐसे ही सीख जाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी 50-60% कॉन्सेप्ट क्लियर है। यही सारी चीजें आगे जाके यूज होनी है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आगे जाकर यूज होती हैं। तो आपका अगर बेस स्ट्रांग है, यू विल गेट वेरी गुड जॉब। और ट्रस्ट मी, इट्स अ फ्यूचर। अभी आने वाले 2-4 सालों में इतना इसका डिमांड आएगा कि अगर किसी को सैसी, पोलो अल्टो, सिक्योरिटी, SD-WAN आता हो तो उसको 30+ सैलरी बहुत आसानी से मिलेगा। एक दो लोग मैं जानता हूँ, दे आर माई फ्रेंड, लाइक, ठीक है, एंड दे आर लाइक बैंगलोर से कंपनी हायर कर रही हैं, एंड इंडिया में यू कांट ट्रस्ट, मतलब कि 70+, 80+, मतलब आर्किटेक्ट, सीनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट लेवल पे रोल पे जो हायर कर रही हैं, बहुत इजीली उनको मिल रहा है पैकेज, क्योंकि उनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी है, 18 साल का एक्सपीरियंस भी है, एंड दे वर्कड ऑन द वेरियस प्रोडक्ट, लाइक उनको SD-WAN आता है, उनको सैसी आता है, उनको फायरवॉल्स आती है, उनको क्लाउड प्रोडक्ट आता है। तो क्यों नहीं पैसे देंगी कंपनी, क्योंकि यही सब मार्केट में चल रहा है, राइट। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। So I believe we are good for today, right? And we'll connect tomorrow again on the same time, guys. Okay, if you allow everyone. Okay, sir. Right, okay. Thank you so much, guys. Right. Bye bye. Take care. Good night. Good Thank night. you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.
All right. So let me share my screen. Good evening, Mujamil, and good evening, everyone. Let me share my screen. Okay, so hope my screen is visible to everyone, right? Can anyone confirm? Yes, visible. Yes, it is visible. Yes, it is visible. Thank you so much. मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं नेटवर्क चेंज कर लूं अपना, नहीं तो ड्रॉप आएगा. All right, so let's start. Right, I think कुछ लोग अभी और ज्वाइन करेंगे, so एक मिनट और वेट कर लेते हैं, then we'll start. So I hope कि आप लोगों को लास्ट क्लास समझ में आया होगा कि how we can configure the brand new firewalls. किसी को कोई क्वेश्चन है आफ्टर द सेशन, किसी तरह का मन में कोई डाउट है, you can ask me, right? कि अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो. We did the firewall configuration yesterday and we understand a step-by-step process how the firewall can be configured, right? जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम एक मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू फायरवॉल में, कैसे हम फायरवॉल का CLI एक्सेस लेते हैं, कैसे हम फायरवॉल का GUI एक्सेस लेते हैं, और जब हम एक्सेस लेते हैं तो कैसे हम मैनेजमेंट इंटरफेस को फिर से हम चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर इंटेंट. तो वो सारी चीज हमने सीखा था. सो इट वाज अ वेरी बेसिक लैब. आप ये समझ सकते हो कि बिल्कुल डे 0 लैब आप इसको बोल सकते हो, कि जहाँ पर आप बिल्कुल एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की. बट अभी माइलस्टोन बहुत लॉन्ग है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ सीखेंगे थ्रू आउट द जर्नी. तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइज, राइट? क्योंकि आप जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे, राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी आस्क 100%, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क. और अगर आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो, सो ट्रस्ट मी, इंटरव्यूअर विल नॉट like you probably not able to give the right impact on the interviewer in terms of the positive impact, so he will be not might be happy. Okay, so the question क्या आ सकता है? देखो, हमारा जो ऑफिशियल मॉड्यूल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, हमारा अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया दैट इज जस्ट फाउंडेशन, फंडामेंटल्स, राइट? कि आप लोग को बेसिक एक फाउंडेशन एंड फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड हो जाए. दो क्लास में जो हमने डिस्कस किया था पिछले कल, और एक क्लास और हमने डिस्कस किया, दैट वाज ऑल फंडामेंटल्स क्लास. कि फायरवॉल्स क्या होती है, सर्टिफिकेशन क्यों पालो अल्टो करना चाहिए, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, राइट? अगर कोई नया है एंड दे वांट टू जस्ट रिकैप, तो विल प्रोवाइड द वीडियोस, आप लोग उसको देख लेना एंड जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास. सो मैं आप लोग उस पे हेल्प करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो विल डू इन दिस वे. सो आज का जो सेशन है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज सेशन इज द मॉड्यूल 1. एंड इस मॉड्यूल के अंदर दो चीजें हैं, दोनों ही थियोरेटिकल हैं, बट ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, सो ये थ्योरी आपको आना ही चाहिए पालो अल्टो के लिए. अगर नहीं आती है तो मतलब प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ. तो आई वुड से कि मतलब आपको अच्छे से पालो अल्टो नहीं आती है, यू जस्ट हैव टू ब्रश अप योर स्किल्स, मैं ये बोलना चाहूंगा, राइट? तो जो पहला चीज है वो सिंगल पास आर्किटेक्चर है, प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है. दूसरा फ्लो लॉजिक है. सो कोई आज हम सिंगल पास आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्लो लॉजिक. अगर हम पर टाइम बचेगा तो, नहीं तो डेफिनेटली विल डू ऑन द मंडे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, राइट? लेट्स स्टार्ट द सेशन. एनी क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट? एनीवन हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड? आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल हूँ. आप लोग अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. सो एटलीस्ट वी कैन डिस्कस 5 मिनट मोर एंड देन वी कैन स्टार्ट, ताकि बीच में फिर से आप लोग को दिक्कत ना आए. ठीक है, so for now I'm taking no questions, right? क्योंकि आप सब silent हो, तो I'm just taking no questions. ठीक है, but feel free to ask anything. So let's start, guys, right? So the architecture and platform module, that is a single pass architecture. What is that, right? And what is a single pass architecture? इसको हम बोलते हैं basically SP3 architecture. SP3 single pass with the parallel processing. So पहले SP3 आप समझो, single pass architecture क्या होता है इसको समझो आप लोग. So let me just jump in the module. So this is the module 1. So जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, right? So people will start from here. What is the SP3 architecture? सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि SP3 architecture क्या होता है.
तो SP3 का पहले तो आपको सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिर आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। SP3 का फुल फॉर्म होता है, SP3 का मतलब ये होता है, फर्स्ट S मीन सिंगल होता है, और P3 का मतलब होता है पास पैरेलल प्रोसेसिंग। सो ये 3 बार P आया है, इसलिए इसको P3 बोल दिया गया है, राइट। सो SP3 का मतलब होता है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यही समझना हमें पूरा मॉड्यूल के अंदर। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे एक TM लगा हुआ है इस वर्ड के आगे। सो दिस इज द ट्रेडमार्क बाय द पालो अल्टो फायरवॉल। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज को, किसी टेक्नोलॉजीज को आपने कॉपीराइट करा रखा है, ट्रेडमार्क करा रखा है, तो दैट वर्ड, सेंटेंस और टेक्नोलॉजी बिलोंग टू यू ओनली। उसको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है, राइट। कोई अदर वेंडर इसको यूज नहीं कर सकता, पर्टिकुलर इस नाम से इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि दिस वाज द इन्वेंटेड बाय द पालो अल्टो इटसेल्फ। इसलिए उन्होंने इसका नाम भी दिया है और इसको आपने ट्रेडमार्क भी करा रखा है। तो कोई अदर वेंडर अगर फोर्टिनेट चाहे इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज करके अपने फायरवॉल में इसको यूज करना, तो नहीं कर सकता। सिस्को भी नहीं कर सकता है, अगर आपको चेक पॉइंट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, कोई भी वेंडर नहीं कर सकता इनफैक्ट, बिकॉज इट्स अ ट्रेडमार्क एंड इट्स अ ग्लोबली नोन। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर कोई यूज करता है तो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। सो द सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर हैज बीन ट्रेडमार्क बाय द पालो अल्टो फायरवॉल, और इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है दैट हैज बीन यूज्ड इनसाइड द पालो अल्टो फायरवॉल। सो समझो आप लोग इसका मतलब क्या होता है। देखो, अब आपको SP3 समझने का जो प्रोसेस है, उससे आपको समझना पड़ेगा कि पैकेट का बिहेवियर समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो देखो, मैं एक पैकेट बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। कोई भी एक पैकेट आप ले लो, राइट। सो मैं कुछ कुछ इसमें इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ, आप लोग समझना इसमें क्या क्या हो सकता है। आप लोग अगर नेटवर्किंग से हो तो यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड इसके अंदर क्या क्या मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा सेक्शन इसके अंदर डाल रहा हूँ, अलग अलग ब्लॉक डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, मान के चलो यहाँ पे आपका सोर्स मैक हो गया, यहाँ पे आपका डी मैक हो गया, डेस्टिनेशन मैक हो गया, यहाँ पे आपका सोर्स IP हो गया, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन IP हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स पोर्ट हो गया, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। हो सकता है कोई एप्लीकेशन IP ID हो, ऐप ID हो गया इसमें, ठीक है। और भी एक दो चीजें इसमें होती है जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, आपको आगे समझ में आएगा। एंड फाइनली इसके अंदर क्या होता है, एक डेटा होता है जिसको आप पेलोड बोलते हो, या आप इसको एक्चुअल कंटेंट बोलते हो। मतलब कोई एक पैकेट होता है, राइट। सो उस पैकेट के अंदर बेसिकली आपका जो ये फर्स्ट ये चीजें हैं, ये वाली, इसको आप बोलते हो लेयर 2 इंफॉर्मेशन। आप हमेशा इसको क्या बोलते हो, दिस इज लेयर 2 इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा जो पैकेट आपका आया IP वाला, इसको क्या बोलते हो बेसिकली, आप इसको बोलते हो दिस इज द लेयर 3 इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा जो क्या है, इसको क्या आप बोलते हो, इसको आप बोलते हो आप हमेशा लेयर 4 इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप लोग को वैसा ही लेयर तो आती होगी आई थिंक। और ये ऐप जो होता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं लेयर 7। सो आप लोग देखो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा वैसा ही, लेयर 1 तो केबल होता है, लेयर 2, 3, 4 एंड 7, 6 और 5 हम जनरली यूज नहीं करते हैं। TCP/IP मॉडल में सिर्फ आपको 4 लेयर्स ही होती है, राइट। सो एक्चुअल OSI मॉडल में 7 होता है, TCP/IP में 4 ही होती है, जिसमें आप डेटा लिंक आपका एंड फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर एंड आपका आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, सीधा एप्लीकेशन लेयर होता है। तो सारा देखो TCP/IP का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, राइट। देन फाइनली मैंने कुछ फील्ड को ब्लॉक छोड़ रखा है, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा सेम पैकेट बिहेवियर में इसका मतलब क्या होता है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो इसके अंदर ये सब 1, 2, 3 फील्ड और यूज होती है, क्या होता है। एंड लास्ट में क्या होता है, डेटा। डेटा क्या होता है कि जब आपने पैकेट बनाया तो उस पैकेट के अंदर कुछ डेटा भी तो भेजोगे। डेटा का मतलब क्या होगा कि जैसे एक PC ये है, इस PC से बात करना चाह रहा है, राइट। ये दोनों PC हैं, आपस में बात करना चाह रही हैं, तो इनके बीच में सबसे पहले एक फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए या एक वायरलेस कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिसको फिजिकल लेयर पे बात करते हैं। तो जब यहाँ से कुछ ये भेजेगा, मान के चलो ये PC हाय लिख कर भेजा, हाय, तो हाय एक आपने टेक्स्ट टाइप किया। जब ये हाय पहुंचेगा तो डेटा आपका हाय होगा, लेकिन इस हाय को पहुंचाने के लिए आपको ये पूरी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 7 की जो प्रोसेसिंग है दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। तो जब आपका पैकेट यहाँ से चलेगा और यहाँ से जब चलकर यहाँ पर पहुंचेगा, तो आपके इस पैकेट में ये जो ऊपर की सारी चीजें दिखाया है मैंने ना,
ये सारी चीजें ऑलरेडी इस पैकेट के अंदर रहेंगी, तभी तो ये पीसी को समझ पाएगा कि क्या सोर्स आईपी है, क्या डेस्टिनेशन आईपी है, क्या सोर्स मैक है, क्या डेस्टिनेशन मैक है। वो सारी चीजें तभी तो पीसी को समझ में आएगा, ऐसे कैसे समझ में आएगा, राइट? मेक सेंस? तो कभी भी जब भी कोई पैकेट बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो मैं आपको एक 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 लाइव एग्जांपल देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द पीसी व्हेनेवर और एनी डिवाइस इनिशिएट द कनेक्शन, मतलब जब भी आप, अब दूसरा एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, एक स्विच है, इस स्विच के पीछे आप पीसी लेकर यहाँ बैठे हुए हो, दिस इज योर पीसी और लैपटॉप। इस स्विच कहाँ से कनेक्टेड है? ये हो सकता है कि स्विच आपका फायरवॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी फायरवॉल से मान के चलो कि आपको इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है आपको, google.com पे जाना है, जस्ट एन एग्जांपल। तो जब ये पीसी का पैकेट बनेगा तो इस पैकेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी ना, आपका लेयर 2 इंफॉर्मेशन भी रहेगा, लेयर 3 भी रहेगा, लेयर 4 भी रहेगा, लेयर 7 भी रहेगा, और आपका कंटेंट रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट जितने पैकेट बनते हैं, और ये जो बीच का मैंने छोड़ा 2-3 चीज ना, और भी चीजें रहती हैं जो मैं आगे बताऊंगा, बट अभी आप इतना ही फोकस करो। बाय डिफॉल्ट जितने भी पैकेट बनते हैं, बिना इन इंफॉर्मेशन के बिना आपका कनेक्शन बन ही नहीं सकता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पैकेट में रहते हैं। तो जब ये पैकेट आपके पालो अल्टो फायरवॉल में हिट करता है, जैसे यूजर के मशीन से पैकेट आया, राइट, आने के बाद ये पैकेट जब पालो अल्टो फायरवॉल पे हिट किया, राइट, ये पैकेट आया और यहाँ पे हिट किया, तो पालो अल्टो फायरवॉल उस पैकेट के साथ क्या करती है? पालो अल्टो फायरवॉल उस पैकेट के साथ क्या करती है? इसी को समझने के लिए आपको ये आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, और दूसरा इसका जो फ्लो लॉजिक है, जो इसका डायग्राम है, जो मैं आपको फ्लो लॉजिक समझाऊंगा कि उस पैकेट के साथ कैसे बिहेवियर होगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो पहले सेक्शन में आप ये समझो कि उस पैकेट को कैसे डिकोड करता है फायरवॉल अपने हार्डवेयर लेवल पे, कैसे उसको प्रोसेस करता है, और फिर आपको दूसरे स्टेप में समझना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पैकेट फ्लो होता है इनसाइड द फायरवॉल्स, ठीक है। तो आप किस तरीके से समझना, तो पहला काम आप समझो कि आपका sp3 आर्किटेक्चर करता क्या है, ठीक है। तो देखो sp3 आर्किटेक्चर समझने के लिए आप ये समझो कि ये पैकेट है, इसके अंदर अभी के हिसाब से कितनी इंफॉर्मेशन है? एक सॉरी, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं कुछ दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो मान के चलिए कि मैं ये कलर ले लेता हूँ, तो मान के चलिए कि ये पहला 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान के चलिए 10 इंफॉर्मेशन है इस पैकेट के अंदर। ये पूरा एक पैकेट है, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा एक पैकेट है। सो एक पैकेट के अंदर 10 इंफॉर्मेशन है, मतलब 10 इंफॉर्मेशन है। तो जब पैकेट फायरवॉल के पास पहुंचेगा तो फायरवॉल इस 10 इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे इनके साथ कैसे बिहेव करना है। तो एक एक करके वो ना सारे जितने पैकेट के अंदर जो भी आपके अंदर आइटम्स हैं, 10 आइटम्स हैं, उसको वो चेक करेगा। तो जब वो चेक करेगा तो फिर फाइनली चेक करने के बाद तो फाइनली अपने पैकेट को बाहर भेजेगा अपने इंजन में वेरीफाई करने के बाद। तो कैसे चेक करता है, क्या चेक करता है, उसको समझो आप लोग। तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मान के चलो कि जैसे ही आपका पैकेट आया यहाँ पे, आपके इस पैकेट में टोटल 10 इंफॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस 10 इंफॉर्मेशन को अब दो तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, एक को हम बोलते हैं सीरियल चेक्स, और एक होता है आपका पैरेलल चेक्स। आप इसको Zscaler में जाओगे तो उसमें बोलते हैं आपका मल्टी स्कैन। Zscaler में आप पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं मल्टी स्कैन। तो सीरियल चेक्स में क्या होता है? सीरियल चेक्स में ये होता है कि अगर आपका 10 इंफॉर्मेशन है, जैसे पहला इंफॉर्मेशन ये है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है, तीसरा इंफॉर्मेशन ये है, चौथा इंफॉर्मेशन ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है आपके पास, 7th ये है, 8th ये है, 9th ये है, 10th ये है। अब ये सारे 1 by 1 आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ऐसे 1 by 1 आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक मान के चलो कि एक कोई मैनुअल चेक करने के लिए बंदा लगा हुआ है, राइट। अब ये एक आदमी यहाँ पे चेक कर रहा है इसको, तो एक एक करके चेक करेगा, एक चेक करेगा, 2 चेक करेगा, 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा। तो हो सकता है कि अगर एक जो यहाँ पे क्यू में जो मैन खड़ा है, इसको चेक करने में एटलीस्ट 10 सेकेंड्स भी लग रहा है, तो आपको 10 चेक करने में आप टोटल कितना 100 सेकेंड लगेगा आपको। इट इज गोइंग टू टेक 100 सेकेंड्स। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं कि इसी चेकिंग्स को करने के लिए मैं इनको सीरियल में ना खड़ा कर मैं इस तरीके से खड़ा कर देता हूं कि मान के चलो कि ये 1 खड़ा है, 2 खड़ा है, 3 खड़ा है, 4 खड़ा है।
मतलब ऐसे एक लाइन में खड़ा रहता हूँ और हर एक के लिए अलग अलग डेडिकेटेड लोग लगा देता हूँ कि तुम इनको चेक करो। तो 1 सेकंड में भी हो जाएगा, 1 सेकंड में मतलब 10 सेकंड में भी हो जाएगा चेक। हर एक कोई 10 सेकंड्स में चेक हो जाएगा आपका। तो फाइनल जो पैकेट सारे एक साथ बाहर आएंगे और 10 सेकंड्स में बाहर आ जाएंगे। तो इसमें आपको 100 सेकंड्स टाइम लगा और इसमें आपको 10 सेकंड्स टाइम लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैकेट को चेक कर सकते हो। तो एक एग्जांपल तो मैंने दिया, आप देखो आप रियल लाइफ में इस एग्जांपल को समझो, फिर मैं इस स्लाइड पे आऊंगा दोबारा से। मतलब मैं कहना है क्या चाह रहा हूँ उसको समझो आप लोग। तो मैं थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने ये तो देखा होगा सबने, आप लोग एयरपोर्ट जाते होगे, मेट्रो स्टेशन जाते होगे, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा स्कैनिंग मशीन। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, राइट। सो ये स्कैनिंग मशीन क्या होता है बेसिकली, आप जैसे मेट्रो पे जाते हो, राइट, तो यहाँ पे एक चैनल होता है, तो यहाँ पे आपके क्यू में लोग खड़े होते हैं, राइट, अलग अलग क्यू में लोग खड़े होते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सेम ही चीज मैं बता रहा था, ऐसे लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सनल्स होता है और वो सबको एक एक करके चेक करते रहता है। अब मान के चलो कि जितने भी लोग क्यू में खड़े हैं, राइट, जितने भी लोग क्यू में खड़े हैं सबके पास एक एक सूटकेस है, सबके पास एक एक सूटकेस है। ऐसा हो सकता है? और ये मशीन यहाँ पे नहीं है, जस्ट थोड़ी देर के बाद भूल जाओ। अब इस बंदे को एक एक आदमी को चेक करना, पहले तो पर्सन्स को चेक करना जितने भी लोग इस चैनल से पास होने वाले हैं, साथ में इनके पास गाइडलाइन है कि जो इनके बिलोंगिंग्स हैं, जो भी इनके बिलोंगिंग्स हैं उसको भी चेक करना है। और उसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कुछ प्रोहिबिटेड आइटम होते हैं, जैसे आप गन नहीं ले सकते हो, कुछ नाइफ नहीं ले सकते हो, कोई भी एक्सप्लोसिव आइटम नहीं ले सकते हो, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं ले सकते हो। तो XYZ जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उसको भी चेक करना है। तो आप सोचो कि इस पैकेट के अंदर ये जो ब्रीफकेस है, सूटकेस है, इस बंदे ने हो सकता है कि बहुत सारा आइटम रख रखा हो, फूड रख रखा हो, वो वाटर रख रखा हो, कोई ई लाइटर रख रखा हो, कोई सिगरेट रख रखा हो, कोई लैपटॉप रख रखा हो। मतलब माइट भी एक पैकेट के अंदर इसके पास 20 आइटम्स होंगे, हो सकते हैं ना। अब इसके पास भी इसी तरह सिमिलर 30 आइटम्स होंगे, 20 आइटम्स होंगे। तो हर एक वेब केस में अपना अपना सबका कुछ ना कुछ आइटम्स होगा। तो अब इस बंदे को जो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल CIF वाले जो हमारे सिक्योरिटी लोग यहाँ पे होते हैं खड़े, उनको चेक करने के लिए ऑलमोस्ट एक बंदे को कम से कम 10 to 15 मिनट लगेगा यहाँ पे, राइट। क्योंकि एक पैकेट को खोलेगा, पहले तो ये ह्यूमन को चेक करेगा, फिर उसको सूटकेस को खोलेगा। इस सूटकेस के अंदर, एक पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने क्या बताया कि एक पैकेट हमारा कोई होता है तो उसके अंदर आपका लेयर 2 इन्फॉर्मेशन हो गया, लेयर 3 हो गया, लेयर 4 हो गया, लेयर 7 हो गया, और भी एक्सेट्रा डेटा होता है। तो एक ही पैकेट है, पैकेट आपका एक है, लेकिन इस पैकेट के इनसाइड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से एक सूटकेस आपके पास एक है, बट इस सूटकेस के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं। तो इफ यू स्टार्ट चेकिंग एवरीथिंग, तो क्या होगा कि ये पूरा जो क्यू लगा है ना, ये गेट फ्रस्ट्रेटेड कि आप पूरे दिन में हो सकता है कि 100 या 200 लोगों को ही मेट्रो आप मतलब भेज सकते हो, क्योंकि आपके सिक्योरिटी चेक्स में इतना टाइम लगेगा। तो इट्स नॉट फिजिबल, लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर मेट्रो में लोग सोचेंगे यार क्या मतलब सही चीज नहीं है, वी शुड अवॉइड इट, और वो अपनी कार से या कुछ और भी अल्टरनेट सोचने लगेंगे फिर कहीं जाने के लिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मुझे ना एक एक करके आदमी को तो मैं चेक कर लूंगा जैसे आप लोग देखते हो, बट सूटकेस जो भी आ रहे हैं ना, इनको चेक खोलकर मुझे नहीं करना है। मैं कुछ मैकेनिज्म ऐसा लाता हूँ कि एक मशीन के अंदर इसके डालता हूँ सूटकेस को, और ये मशीन के पास इतनी इंटेलिजेंस हो कि ये अपने आप ही क्या मेरे पैकेट के अंदर है इंफॉर्मेशंस, मतलब एक पैकेट के अंदर कितनी सारी जो आइटम्स हैं उन सबको स्कैन कर ले और अपने आप ही इसको समझ जाए। तो पैकेट खुलेगा भी नहीं, और आपको यहां से यहां जाने में अगर 2 सेकेंड्स लगता है तो विद इन 2 सेकेंड्स, अब इसके अंदर 20 आइटम्स हैं, उन सबको स्कैन कर लेगा वो, सबको स्कैन करके, और 2 सेकेंड्स पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे एक रिपोर्ट आ जाएगा जहां पे एक और सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ बैठे होंगे आपके, ऑन दे विल गेट कि भाई ये बंदा क्या ले जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। दे विल इजीली अंडरस्टैंड कि ये बंदा क्या ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर पैकेट को बेसिकली हर तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, हर तरह के सेंसर लगे होंगे कि मान के चलो कि हर एक कॉर्नर पे एक ही टाइम पे कि ये वाला सेंसर जैसे पैकेट आया इसके लिए चेक कर रहा है कि कोई यहाँ पे नाइफ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये वाला गन के लिए चेक करेगा, ये वाला कोई भी केमिकल्स के लिए चेक करेगा, ये फूड चेक कर रहा है, ये वाटर चेक कर रहा है, ये कुछ और भी चेक कर रहा है। तो सारे एक साथ ही एक्टिवेट हो गए, और एक साथ मान के चलो कि उस बॉक्स पे एक रे डाले या कुछ भी अपना सेंसिंग आइटम डाले, एंड दे गेट्स एवेल्युएटेड कि इस पैकेट के अंदर क्या है।
और एक ही साथ यहाँ डिस्प्ले पे आपको रिपोर्ट आ गया। तो 2 सेकेंड में पूरी पैकेट आपका स्कैन होकर फाइनली ये आउट चला गया। तो द टाइम इज गोइंग टू बी सेव्ड, सो योर प्रोसेसिंग इज गोइंग टू बी फास्ट। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी, आपका थ्रूपुट बहुत कम था, आपकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही लो थी। बट ये आपने जैसे ही इसको आपने टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, आप इसको इनहेंस किया, योर थ्रूपुट इज गेटिंग हाई, योर स्पीड इज गेटिंग हाई, योर परफॉर्मेंस इज गेटिंग हाई। तो आपका मतलब लाइफ इज वेरी गुड, लाइफ इज वेरी गुड। तो ये हमारा होता है एक तरह से, आप जो मैं बताने की आगे कोशिश करूंगा उसी का एक लेमैन एग्जांपल है कि सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ एक समय पे आपको जितने चेक्स करने हैं आप कर डालिए। आपको डब्बे को पैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है। इस पैकेट के अंदर 20 आइटम्स हैं, लिव इट 20 आइटम्स, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बट 20 आइटम विल बी गेट चेक्ड एट वन गो। आपको 20 बार उसको एक एक करके चेक नहीं करना है, आपको 20 आइटम एक ही बार में चेक हो जाएंगे और 2 सेकंड के अंदर ही पूरा आपका रिपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। एनीवन आस्किंग एनीथिंग? पापा ये बोल रहे हैं वहां बनेगा। अरे म्यूट कर लीजिए, एक मिनट सत्यम जी, म्यूट कर लीजिए आप। सो यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिकली आपका सारा कुछ प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा मैं नीचे स्लाइड पे जाता हूँ, देखेंगे आप लोग, जैसे आप लोग देखे होंगे कि एयरपोर्ट पे कुछ इस तरह की आपका बहुत सिस्टम रहता है जहाँ पे वैसे ही सेम आपका स्कैनर्स लगे होते हैं, एंड यहाँ पे क्यू में आप डालते हो और आपकी जब भी लगेज जाता है दे गेट स्कैन्ड इन द एयरपोर्ट। आप जब भी इमिग्रेशन पे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आप जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, राइट। तो ये इस तरीके से आपका टाइम सेव होता है, वरना ये पूरे दिन चेक करें तो चेक ही करते हैं। हर एक बैग को अगर खोल के चेक करने लगे, एक एक बैग में 50-50 आइटम होते हैं, 100-100 आइटम्स होते हैं, तो बिल्कुल मतलब एंडलेस सिचुएशन हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। और ये जो स्कैनर्स होते हैं दे आर वेरी पावरफुल, दे कैन स्कैन एवरीथिंग, कि आपके गन है नहीं, नाइफ है नहीं है, वाटर है, सनग्लास है, किस तरह कार्ड्स है, किस तरह का कोई, किस तरह का कोई और भी आइटम्स है, मेटल वगैरह, तो सारा कुछ स्कैन करके वो रिपोर्ट मिल जाता है। तो वो सिक्योरिटी पर्सनल अपने आप ही जान जाते हैं कि क्या करना होता है। अब इस स्टोरी को बताने से क्या रेलिवेंट है मेरा सिंगल पास विद पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर से? बिल्कुल सेम रेलिवेंट है। जिस तरीके से ये मशीन काम करती है, जिस तरीके से स्कैनिंग काम करता है, जिस तरीके से ये एक एक पैकेट को स्कैन करता है, सेम चीज पालो अल्टो फायरवॉल करती है विद दिस टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं SP3 आर्किटेक्चर, विद द सेम प्रोसेस। कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सूटकेस जा रहा है और वहां पे आपको IP पैकेट जाएगा। यहाँ भी पैकेट है बट इस पैकेट का नाम सूटकेस है, और इसके अंदर भी आइटम है 20, बट यहाँ पे एक्चुअली आपका IP पैकेट होगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और उस IP पैकेट के अंदर फिर से आपके अंदर वही सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। तो यही आपके जितने भी आइटम्स होंगे इसी पैकेट की एक बड़ा सा पैकेट होता है, और इस पैकेट के अंदर आपका लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 और एप्लीकेशंस, कंटेंट, यूजर ID, डेटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होंगे। तो जैसे ही ये पैकेट आपका पालो अल्टो फायरवॉल पे हिट करता है, मान के चलो कि पैकेट पालो अल्टो फायरवॉल पे हिट कर गया, तो इसकी डिजाइन ऐसी होती है पालो अल्टो फायरवॉल की, इट्स डिजाइन इन दिस वे कि जब मेरा पैकेट यहाँ पे हिट किया तो इसके पास खुद का अपना पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है, देखिए यहाँ पे, और एक सिंगल पास सॉफ्टवेयर होता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर प्लस सिंगल पास सॉफ्टवेयर, ये जो SP3 आर्किटेक्चर है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, सिंगल पास सॉफ्टवेयर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर। तो सिंगल पास सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब आपसे पूछा जाए कोई सिंगल पास सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिंगल पास सॉफ्टवेयर इज नथिंग। सिंगल पास सॉफ्टवेयर आपका सिंपली जो आपका पैन OS होता है पालो अल्टो का, उसी को सिंगल पास सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कि मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर इसके पैन OS रनिंग कर रहा है उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है? जैसे इसके अंदर आपका CPU लगा हुआ है, इसके अंदर रैम लगा हुआ है, इसके अंदर ASICs लगे हुए हैं, चिपसेट लगे हुए हैं, वो सारे आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ कुछ इस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं, कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि योर फायरवॉल इज गोइंग टू बी प्रोसेस द पैकेट इन द वेरी फास्ट वे विद द पैरेलल प्रोसेसिंग। तो कैसे होता है आप समझिए इसको। तो होता है क्या है कि जब पालो अल्टो फायरवॉल पे ये पैकेट हिट करता है तो ये फायरवॉल क्या करती है, इसके पास एक प्रोविजन होता है कि हर एक चीज के लिए, जैसे आपका लेयर 2 यहाँ पैकेट आया, जैसे आपका मैक एड्रेस आया, मैक एड्रेस क्या होता है? मैक लेयर 2 होता है। आपके पास IP आया, तो IP क्या होता है? लेयर 3 आया। आपके पास क्या होगा? आपके पास पोर्ट नंबर होगा, पोर्ट किसको हैंडल करता है? लेयर 4 हैंडल करता है। आपके पास क्या होगा? एप्लीकेशन होगा, कौन हैंडल करता है? लेयर 7 हैंडल करता है। और क्या हो सकता है? आपके पास
कोई थ्रेट प्रिवेंशन होगा, कंटेंट आईडी हो। कंटेंट आईडी क्या होती है, जैसे में आपका कोई भी अटैचमेंट हो गया, कोई भी मैसेज हो गया, कोई भी आप भेज रहे हैं ईमेल, कोई एक्सेल फाइल हो गया, आप कोई मेल में कोई कंटेंट बॉडी लिख रहे हैं, हाई लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं, वो सब कंटेंट होता है, राइट। और क्या चेक करना है इसमें, और भी इसके अंदर पॉलिसी चेक करने के लिए अलग इंजन होता है। जैसे पॉलिसी मतलब जैसे ACL आप बनाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, आप QS डिफाइन करते हैं, राइट। ये सब चीज चेक करने के, तो हर एक चीज के लिए क्या होता है, देखिए पॉलिसी के लिए अलग इंजन है, एप्लीकेशन के लिए अलग इंजन है, यूजर आईडी के लिए अलग इंजन है, कंटेंट के लिए अलग इंजन, नेटवर्किंग के लिए अलग इंजन है। तो हर एक चीज को अलग अलग लोग चेक करेंगे, हर एक चीज को अलग अलग जो प्लेन है उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद उसको डेडिकेटेड रिसोर्स ऑफ द हार्डवेयर उसको मिलेगा चेक करने के लिए, तभी तो एक समय पे ही सबका प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो इसका एक इस तरीके से लेमन एग्जांपल समझ सकते हैं कि देखिए मान के चलिए कि ये आपके यहाँ पे फायरवॉल है, मैं एक ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को कि मान के चलिए कि ये आपके एक पालो आल्टो फायरवॉल है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं। तो मान के चलिए ये आपकी एक फायरवॉल है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ। ये क्या आपकी एक फायरवॉल है। अभी एक पैकेट यहाँ से आया, ठीक है, एक पीछे से पैकेट आया एक यूजर्स का, मान के चलो कि यहाँ पे एक यूजर पीसी से यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, पीसी यूजर है, पैकेट आया। तो अब पैकेट आने के बाद क्या हुआ कि मान के चलिए कि ये पैकेट जैसे ही यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इस पैकेट के अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक हार्डवेयर होगा, मान के चलिए कि एक यहाँ पे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये CPU क्या करेगा कि अब ये एक तरह से मास्टर CPU की तरह एक्ट करता है, इसको आप समझिए मास्टर CPU की तरह एक्ट करता है। तो ये CPU क्या करेगा, कुछ इस फायरवॉल के अंदर ही स्मॉल स्मॉल CPU होंगे जिसको हार्डवेयर बोलते हैं, और एल्गोरिथम जो मैं बताया पीछे का उसको मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा आप लोग का भी, इसके बाद बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये भी ये सब CPU इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सब CPUs। सब CPU का मतलब कि स्मॉल स्मॉल CPU बोल सकते हैं। तो मास्टर CPU जैसे इस पैकेट आया, इस पैकेट के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसके अंदर लेयर 2 हो सकती है, लेयर 3 हो सकती है, लेयर 4 हो सकती है, लेयर 7 हो सकती है, आप इसके अंदर URL कोई हो सकता है, कोई कंटेंट हो सकता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई इसमें आपका पॉलिसी चेक करना उसके लिए। तो मान के चलिए कि जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब नेटवर्किंग का ही पार्ट आता है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये लेयर 2 के लिए मान के चलो इसको भेज दिया कि तुम मैक एड्रेस चेक करो, लेयर 3 के लिए इसको भेज दिया, लेयर 4 के लिए इसको भेज दिया, लेयर 7 के लिए इसको भेज दिया, कंटेंट की लिस्ट के लिए भेज दिया, एप्लीकेशन की लिस्ट के भेज दिया, कुछ और मिसलेनियस ट्रैफिक है तो एक और CPU यहाँ भेज दिया। तो मास्टर CPU ने क्या किया, सारे पैकेट को जैसे ही आया उस पैकेट के इंफॉर्मेशन को, कि मतलब ये CPU you are just responsible for the layer 2 inspection, you are just responsible for the layer 3 inspection, layer 4 inspection, तो सबको भेज दिया। मान के चलो इन सबको भेजने में एक सेकंड इसको लगा, राइट, जस्ट इतना टाइम नहीं लगता है, बट जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो इन सबको प्रोसेस करने में फाइनली आपको देखो पैकेट यहां से इन हुआ है, पैकेट इज जस्ट इन, राइट, और आपको पैकेट को आउट जाना है। तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से कर दिया पैकेट को कि सब क्या करेंगे, एक ही टाइम पे इसको प्रोसेस कर देंगे, क्योंकि सबका डेडिकेटेड हार्डवेयर है, तो सब एक ही टाइम पे इसको प्रोसेस कर देंगे, सारे एक ही टाइम पे प्रोसेस कर देंगे। तो फाइनली आपका 1 सेकंड अगर इसने भी लिया तो 1 सेकंड इसने भी लिया, 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 तो सबने 1 सेकंड लिया। तो आपका टोटल पैकेट का लाइफ साइकिल कितना होगा, अगर आप दोनों को जोड़ते हैं 1 और 1, तो आपको 2 सेकंड्स में पूरा पैकेट बाहर आ गया। जस्ट एन एग्जांपल, इतना टाइम लगता नहीं है, बस मैं आप लोग समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट इस तरीके से। तो हुआ क्या, एक ही पैकेट आपका आया एंड आपका एक ही टाइम पे ये इस तरीके से प्रोसेस हो गया। अगर ऐसा आर्किटेक्चर नहीं होता तो क्या होता, तो ये मान के चलो कि फायरवॉल है, फिर से अगर ये आर्किटेक्चर नहीं होता तो क्या होता है, तो मान के चलिए कि आपका एक ही CPU है, अब ये पैकेट आया तो इस पैकेट के अंदर 10 इंफॉर्मेशन है, तो ये CPU क्या करता, पहले आपका लेयर 2 चेक करता, उसको 1 सेकंड लगता, या मान के चलो लेयर 3 करता, फिर 1 सेकंड लगता, फिर 4 करता, 5 करता, इस तरह 10 करता, तो टोटल इसको पैकेट को आउट होने में इसको 10 सेकंड लग जाता, राइट, क्योंकि
हर एक आइटम को उसको चेक करना पड़ता है, जिसको हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया। मतलब आपका पैकेट आया, उसकी इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट आपका मॉड्यूल्स हैं जो हार्डवेयर के अंदर ही इनबिल्ड होते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे दिखेंगे आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रिप्रेजेंटेशन में। बट इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाता है। तो होगा क्या कि फाइनली आपका पैकेट जो है प्रोसेस बहुत फास्ट होगा एंड इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। तो इस तरीके से आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग काम करती है और इस तरीके से सर आपका अगर सीरियल। सब सीपीयू कोई एक पैकेट ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाया या किसी भी रीजन से इसको डिनाई कर दिया तो क्या होगा? एक अगर मान लेते हैं कि कोई इंजन है आपका, राइट, जैसे आपकी कार होती है, राइट। अब आपकी कार में अगर स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगा तो आपकी कार नहीं चलेगी, फिर आपको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा या उसको आपको ठीक कराना पड़ेगा। सेम चीज ये हार्डवेयर है। अगर सीपीयू काम करना बंद कर दिया तो यू जस्ट हैव टू वर्क विद अ टैग केस। आपको टैग केस खोलना पड़ेगा। या जो रियल सिनारियो होता है उसमें होता क्या है कि आपकी जो फायरवॉल्स लगी होती हैं वो दो में लगी होती हैं। एक फायरवॉल प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एचए में लगी होती है। तो किसी रीजन से सीपीयू नहीं काम करने का मतलब कि आपका ब्रेन डेड हो गया। समझ रहे हैं? कोई भी अगर फंक्शन नहीं काम कर रहा तो आपका पार्शियली ब्रेन डेड हो गया एंड यू नीड अ सीरियस एक्शन, तो आपका फेल ओवर हो जाता है फिर, तो आपका ट्रैफिक चलेगा। बट अगर आपको कोई सीपीयू हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो यू हैव टू रिप्लेस और आर में करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि हार्डवेयर कैसे ठीक करोगे आप अगर सीपीयू नहीं काम कर रहा, मतलब चिपसेट खराब हो गया ना आपको उसका। जैसे तो मोबाइल में आपका सब सीपीयू का काम ये है कि फास्ट प्रोसेसिंग के लिए बस यूज होता है। हाँ, फास्ट प्रोसेसिंग सीपीयू इसका इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, हमारा इस तरीके से प्रोसेसिंग किया हुआ है कि इट इज गोइंग टू गिव यू द फास्ट प्रोसेसिंग थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पैकेट। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस डायग्राम पे हम आएंगे। एक मिनट मुझे दीजिए आप लोग। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ेंगे, इसकी जो प्रोसेसिंग है, अब देखिए अभी तक मैंने इसका डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ के बता नहीं था, बट आप पढ़ेंगे तो देखिए कितना पावरफुल इसके बारे में लिखा हुआ है कि Palo Alto Networks next generation firewall are based on the unique, very important word, unique single pass parallel processing architecture। ये यूनिक है, इसीलिए Palo Alto आज के डेट में इतना फेमस है। और जी स्केलर, क्योंकि इन लोगों ने जो प्रोसेसिंग यूज किया, जी स्केलर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करता है, लेकिन उसका नाम होता है मल्टी स्कैनिंग प्रोसेस, राइट। मल्टी स्कैनिंग प्रोसेस, इसी को पैरेलल प्रोसेसिंग को ही उसका नाम चेंज करके मल्टी स्कैनिंग कर दिया बस, कि ताकि अगर आप ये यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेडमार्क है तो आपका जी स्केलर को ऊपर वो केस कर देगा Palo Alto। तो उन्होंने मल्टी स्कैन कर दिया। मल्टी स्कैन का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। कहीं मल्टी स्कैनिंग आपको कोई पूछे तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि यही प्रोसेस होता है। मल्टी स्कैन का मतलब कि आपका सीरियलाइजेशन नहीं होता, वहां पे आपका पैरेलल प्रोसेसिंग की तरह ही काम करता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि Palo Alto networks next generation firewall are based on the unique single pass parallel processing SP3 architecture which enables high throughputs, low latency network security। लो लेटेंसी क्यों, हाई थ्रूपुट क्यों? सो लो लेटेंसी इसलिए कि आपको वेट नहीं करना, आपका पैकेट बहुत फास्ट जाएगा तो लेटेंसी आपकी लो जाएगी। अगर लेटेंसी हाई है मतलब आपका स्लो प्रोसेसिंग है। अगर आपकी लेटेंसी लो है तो बट नेचुरल आपका थ्रूपुट, मतलब कि आपकी जो कैपेसिटी है प्रोसेस करने का पैकेट्स का वो ज्यादा होगा। मतलब अगर 10 सेकंड में आप 10 पैकेट प्रोसेस कर रहे हो तो आपकी, और आप अगर दूसरी कोई नॉर्मल फायरवॉल अगर 10 सेकंड में 2 पैकेट प्रोसेस कर रही है तो बट नेचुरल है जो फायरवॉल आपके 10 सेकंड में 10 पैकेट प्रोसेस कर रही है उसकी थ्रूपुट ज्यादा हो गई, राइट, क्योंकि वो ज्यादा कैपेसिटी उसके पास है करने के लिए। तो SP3 आर्किटेक्चर आगे की लाइन में लिखता है Palo Alto network solve the performance problem that play today network security infrastructure which is the SP3 architecture which combines two complementary component जो single pass सॉफ्टवेयर बोलते हैं एंड पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग SP3 आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसको आप देखो जो मैं बताया हूं वो कैसा दिखता है एक्चुअली। सो इस डायग्राम को देखो, आर्किटेक्चर कैसे काम करता है देखो आप लोग। तो होता क्या है कि आपके लिए क्या होता है कि हर एक टाइप के लिए आपको क्या होगा, SSL डिक्रिप्शन करना हो, IPsec का पैकेट एक्सेस करना हो, कोई डिकम्प्रेशन करना है, कोई QoS चेक करना है, कोई ARP राउटिंग मैक लुकअप देख रहे हैं यहाँ पे राउटिंग, कोई NAT करना है, कोई सिग्नेचर मैच करना है, सबके लिए CPU एंड रैम अलग अलग हैं। मतलब ये CPU के बाद जैसे ही पैकेट आएगा ये क्या करेगा, अच्छा तुमको सिग्नेचर मैच करना है तुम यहाँ पे जाओ, ठीक है, तुम्हें को SSL चेक करना तुम यहाँ पे जाओ, तुमको IPsec चेक करना तुम यहाँ पे जाओ, तुमको डिकम्प्रेशन करना यहाँ पे जाओ, तुमको QoS चेक करना यहाँ पे जाओ, तुमको ARP लुकअप करना यहाँ पे जाओ, तुमको NAT करना यहाँ पे जाओ। ये सारा कुछ करके फाइनली आपको पैकेट आउट चला जाएगा।
इस तरीके से डेडिकेटेड कंट्रोल प्लेन सीपीयू जो होता है, इसी को हम बोलते हैं मास्टर सीपीयू, इसको समझ सकते हैं डुअल सीपीयू कोर, कि जैसे ही आपका कंट्रोल प्लेन पे पैकेट लैंड करता है डेटा प्लेन के लिए, वो एलोकेट करता अलग अलग सीपीयू, अलग अलग रैम, जो हर एक काम के लिए डेडिकेटेड होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके सिग्नेचर मैच हार्डवेयर इंजन पे जाता है, तो पालो अल्टो सारे सिग्नेचर, जैसे आपका थ्रेड का सिग्नेचर हुआ, वल्नरेबिलिटी का सिग्नेचर हुआ, आपका किसी तरह का एंटी स्पायर का सिग्नेचर हुआ, किसी तरह का आपका वाइल्ड फायर सिग्नेचर हुआ, किसी तरह का आपका कोई यूआरएल का सिग्नेचर हुआ, वो सारा कुछ वो चेक करेगा एंड देन दे विल प्रोसेस द पैकेट। इस तरह से कोई आपका आईपीसेक का पैकेट है, उसमें आपका आईपीसेक की पूरी पैरामीटर को चेक करेगा, कोई क्यूएस है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेगा, आपका राउटिंग चेक करना हो, आर्प चेक करना, बताया था ना मैंने आपको, मैक लुकअप करना है, नेट करना है, वो सारी चीजें चेक करेगा, अलग अलग इनके प्रोसेसिंग होते हैं। तो ये हमारा ये फीचर होता है कि इसमें आपका जो कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन दोनों सेपरेट होते हैं, लेकिन जैसे ही पैकेट आपका कंट्रोल प्लेन पे लैंड होता है, कंट्रोल प्लेन क्या करता है, उस पर्टिकुलर पैकेट को डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्लेन जो उसको एवोल्यूएट करेंगे, उस पर प्रोसेस करेंगे, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड एंड उस पे उसका एक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन है यहाँ तक मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि 30 मिनट्स मैं ही बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो आप लोग मुझे बताएं अगर कुछ समझ में आया नहीं आया, जो भी है। देवाशीष आप हैंड रेज कर रखे हैं, बताइए। सर यहाँ पे जो डुअल सीपीयू में कंट्रोल प्लेन एंड डाटा प्लेन बताए, पर ये जो राउटिंग शायद राउटिंग प्रोसेस जो होता है वो तो कंट्रोल प्लेन में जाता है ना आर्किटेक्चर में, वो डाटा प्लेन में नहीं जाता है। आप बिल्कुल राइट हैं, आप बिल्कुल राइट हैं। ये अभी मैं इस पे आने वाला था। इस पे होता क्या है कि जहाँ पे सिंगल सीपीयू होता है, राइट, सिंगल सीपीयू होता है, उसके अंदर हमारा कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन का दो हमारा मॉड्यूल है। जब आप कभी राउटर पे देखेंगे, राउटर में कभी भी आपका डुअल सीपीयू नहीं होता है। कभी किसी दूसरे डिवाइस में देखेंगे तो आपका डुअल सीपीयू नहीं होता, आपका वहां पे हमेशा सिंगल सीपीयू होता है। उसी सीपीयू को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल प्लेन का भी, डेटा प्लेन का भी, सेम सीपीयू का। तो जो कंट्रोल प्लेन का राउटिंग का इन्फॉर्मेशन होता है वो करता है, डेटा प्लेन का जो होता है वो अपना डेटा प्लेन वाला वही सीपीयू करता है, दोनों अलग अलग फंक्शन करता है। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा पालो अल्टो में डिफर करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफर करता हूँ क्या नहीं डिफर करता है। मैं थोड़ा सा यहाँ जाता हूँ आगे वाली स्लाइड पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ गया वो। देखिए, अब आपका जब आपसे कोई पूछे कि आपका कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, ठीक है, सीपीयू का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पालो अल्टो फायरवॉल, अगर कोई पूछ दे आपसे, मैं अभी इसी पे आने वाला था बट यू आस्क वेरी नाइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ अभी आप लोगों को कि अब आपसे पूछा जाएगा, एक मिनट इसको मैं आता हूँ, तब तक मैं पूछता किसी और को क्वेश्चन है इस पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर में, ताकि कंक्लूड कर लेते हैं इस स्लाइड को, फिर हम विल मूव टू दिस वन। एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव, एनीवन, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि आर्किटेक्चर क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, SP3 का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? आई ट्राई माय बेस्ट, बट फिर भी बताओ आप लोग। सर आई एम ऑडिबल? सर मैं बस एक मिनट, हाँ बताइए बताइए रमेश। एक्चुअली ये इधर एक पालो अल्टो में मास्टर सीपीयू होता है और बाकी के जो सब सीपीयू होते हैं, और मास्टर सीपीयू सबको इंफॉर्मेशन डिवाइड कर देता है, जैसे L2 L3 L4। हाँ एग्जैक्टली, उसका काम डिस्ट्रीब्यूशन का है। हाँ, तो अगर L2 इंफॉर्मेशन L3 इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग करने वाला सब सीपीयू है, अगर वो फॉल्टी होता है तो उसके लिए अलग सा iOS रहता है क्या अंदर, मतलब जैसे फर्मवेयर रहता है वैसा? अगर वो खराब हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? और नहीं, अगर हार्डवेयर खराब हो जाता है, अगर हार्डवेयर डीमंस कुछ खराब हो जाते हैं, A6 खराब हो जाता है, एक मिनट म्यूट करता हूँ। जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट कर दीजिए अपने आप को, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा, वीडियो अच्छी जाएगी आप लोग के लिए। तो आप लोग जब इसको रिकैप करोगे तो आप लोग परेशानी नहीं होगी। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आपका हार्डवेयर जो होता है, बेसिकली अगर हार्डवेयर में कोई डीमन में प्रॉब्लम आ गई, कोई डीमन आपका करप्ट हो गया, किसी तरह का कोई हार्डवेयर में A6 में प्रॉब्लम आ गया, कोई CPU फॉल्टी हो गया, राइट, तो आप उसको नहीं रिपेयर कर सकते। दैट इज नॉट रिप्लेसेबल। जो हार्डवेयर वो होता है, हार्डवेयर कैन नॉट बी रिपेयर ऑटोमेटिकली। हाँ, आपका अगर सॉफ्टवेयर क्रैप्ट हो जाता है, कोई OS वर्जन क्रप्ट होता है, तो आप उसको रीसेट कर सकते हो, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। बट हार्डवेयर ओनली कैन बी RMA। RMA मींस कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, आप वेंडर से बात करके। समझे रमेश जी? यस, मतलब टैग रेज करके। हाँ, टैग रेज करके आप उसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, समझ में आ गया। हाँ, थैंक यू सो मच।
और बताइए, और बाकी लोग पूछ रहे थे, कुछ और भी पूछ रहे थे, अनम्यूट थे काफी लोग। मदन हाँ आप कुछ सर, पूछ रहे हैं? जी सर, जैसे आपने बताया कि पैकेट अंदर जाता है और उसके बाद L2 पे, L3 पे, L4 या L7 में वो पैकेट डिवाइड होके सब में सब सीपीयूज में चला जाता है। उसके राइट। बाद फिर से पैकेट एक सिंगल में बन जाता है क्या, जैसे वो पैकेट को तोड़ता है? हाँ हाँ राइट, एग्जैक्टली। जब आपका पैकेट, जब यहाँ पे पैकेट जब पूरा फायरवॉल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग, लेकिन जब ये आउट होने से पहले वो पैकेट फिर एक ही बन जाता है। दैट इज गोइंग टू रीअसेंबल। आप इस तरह समझ सकते हैं कि मतलब आपका फ्रेगमेंटेशन हुआ पैकेट का, बट फायरवॉल बाहर भेजने से पहले उसको किसी सीरियल इंटरफेस या मतलब किसी इथरनेट इंटरफेस से बाहर भेजने से पहले उस पैकेट को एक ही बना देती है फिर से। ओके सर। ओके, यस सर। सर थैंक यू। आई हैव अ हाँ क्वेरी। सो हाँ बताइए। यहाँ पे जो SP3 प्रोसेस हो रहा है, ये हर पैकेट के लिए होगा या फर्स्ट पैकेट ये मतलब एक सेशन जा रहा है तो सेम सेशन फिर से आ रहा है, सेम प्रोसेसिंग होगा मतलब हर पैकेट का? दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन। सो देखिए, होता क्या है कि जो एक बार पैकेट प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, तो उस पैकेट के लिए सेशन बन जाता है। एक बार पैकेट जब आपका कोई चला गया है फायरवॉल के अंदर, तो फायरवॉल इज गोइंग टू क्रिएट अ सेशन, इसीलिए इसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं। तो एक बार अगर सेशन आपके फायरवॉल में बन गया, तो अगली बार सेम पैकेट आएगा ना, तो ये सारी चीजें जो हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सेशन चेक करेगा और उस सेशन के हिसाब से उस पैकेट को प्रोसेस कर देगा। तो हर बार नहीं करेगा वो, एक ही बार नया पैकेट के लिए वो पूरा प्रोसेस करता है, देन क्रिएट द सेशन। जो मैं अभी आप लोग को जो पैकेट फ्लो बताऊंगा ना इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो जाएगा कैसे सेशन बनता है और किस केस में आपका पैकेट फास्ट पाथ में जाता है और किस केस में स्लो पाथ में जाता है। तो अभी कोई भी नया पैकेट आएगा तो वो स्लो पाथ में जाएगा। ये भी एक इंटरव्यू का मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन है स्लो पाथ एंड फास्ट पाथ कि जो पूछा ही जाता है। सर हाँ बताइए। सर वो जो पैकेट एक बार जाएगा एक फर्स्ट टाइम में वो आइडेंटिफिकेशन के लिए सोर्स से जो भी कोई पैकेट आ रहा है उसका आईपी अपने में स्टोर करेगा, आई थिंक। और फिर देन आफ्टर अगर वो दोबारा से रिपीट करता है सेम पैकेट, तो एटलीस्ट वो स्विच की तरह एक्ट करके उसी पैकेट को दोबारा से वो रीड नहीं करेगा। आपने कैसे सुना है, कैसे वर्ड सुना है, कैसे वर्ड कैसे होता है ना, कैसे होता है आपने सुना होगा। इस तरह से मेमोरी, हाँ मेमोरी कैसे बनाते हैं, सेशन बना लेता है, इसको बोलते हैं सेशन बनाना। हाँ, तो जब पहली बार जब पैकेट आता है ना, जैसे यहाँ पे जैसे पैकेट आया फायरवॉल के पास, तो फायरवॉल उसको ये सारा प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन सेम पैकेट अगर दोबारा आएगा ना, तो उसके पास ऑलरेडी एक कैसे बना होगा, मतलब एक सेशन टेबल बना होगा, उस सेशन टेबल से मैच करके उसको प्रोसेस कर देगा। तो दोबारा उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो मतलब बहुत सर फास्ट प्रोसेसिंग है। हाँ, जैसे सर स्विच L2 स्विच जो आपने इसमें टेबल क्रिएट कर लेते हैं ना, उसका मैक एड्रेस के जैसे हाँ मैक टेबल क्रिएट होता है, तो बार बार उसको पूरा फॉरवर्डिंग लुकअप नहीं चेक करना पड़ता है, हाँ, तो वो उसी तरह से स्विच करता है सिर्फ पैकेट तो सर सेम। इसमें कैच, आई थिंक कैच में वो क्या कैश मेमोरी में क्या रखता है उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए? ये पूरा डेटा रखता है? सेशन टेबल पूरा एक सेशन बनाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेशन टेबल बनती है तो सर पूरी सेशन, सर हाँ। जैसे कि इसकी जो मेमोरी जो आपने बताया था कल, अगर इसे, क्योंकि हार्डवेयर है ये और डिवाइस है, अब इसमें अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा इसमें डिवाइस, अगर सेशन पे बनाएगा तो सेशन जो होगा तो बहुत सारे उसका जो बंडल रहेगा, जो पैकेट रहेगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, केबी का, सॉरी MB GB का, ठीक है। और जो स्विच रहता है वो केवल उसका मैक एड्रेस रखता है, तो मैक एड्रेस आई थिंक 1 KB का होता है। और फिर उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो क्या करता है कि अगर वो उसके अंदर में नहीं रहता है, जैसे DSCP जो भी कुछ होता है, तो जितने दिन का आप वैलिडेशन लगाते हो डेट के बाद वो हटा देता है उसको, मैक एड्रेस को। इसमें कुछ ऐसा सेशन का होगा तो मान लीजिए 1, 2 MB, 4 MB या 10 MB का, मैं बताता तो हूँ बहुत सारा अगर MB होगा तो उसका मान लीजिए 64 GB रैम है, मेमोरी तो भर गया, फिर नेक्स्ट वो कैसे उसको मतलब मैं समझ गया आपको, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए पहली बात, जब आप हार्डवेयर खरीदते हैं ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब भी कोई हार्डवेयर आप खरीदेंगे तो आपको लिमिटेशंस होंगे। जैसे आप छोटा फायरवॉल खरीदा आपने, तो छोटा फायरवॉल सिर्फ आपको 4200 न्यू सेशन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। देख लो इसकी लिमिटेशन, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं ना। पहली बात एक चीज समझिए, आप जैसे जैसे हार्डवेयर बढ़ाएंगे आप,
वैसे वैसे आपका सेशन का नंबर बढ़ते चला जाएगा। तो हर एक फायरवॉल की एक लिमिटेशन होती है कि कितना सेशन मैक्सिमम, देखो यहाँ पे कितना आई थिंक 64 lakhs है आई बिलीव। अब जो जितना बड़ा करते जाओगे फायरवॉल उतना आपका 720 न्यू सेशन पर सेकंड है, और आप इसमें मैक्सिमम सेशन इसमें नहीं दिया है, ये देखो इतना सेशन, आई थिंक पता नहीं कितना नंबर है, ये देख लो आप लोग। तो ये हर एक फायरवॉल की लिमिटेशन कितना सेशन वो मैक्सिमम रख सकता है। पहली बात तो ये आपके हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं। तो आपके कंपनी में एप्लीकेशन से यूजर के हिसाब से आपको फायरवॉल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम सेशन हो सकता है, ये आर्किटेक्ट आपको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बहुत सारे यूजर बैठा दिया, 5 लाख यूजर ऑफिस में बैठा दिया, आपने एक फायरवॉल लगा दिया, तो कहाँ से कर पाएगा, फायरवॉल डेड हो जाएगा, उतना सेशन हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आपको जितने नंबर यूजर हैं उसी हिसाब से आपको फायरवॉल को डिजाइन करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन आपने उठाया कि अगर यूजर बार बार आएगा, सेशन बनते जाएगा तो वो फुल हो जाएगा मेमोरी। तो सेशन इज नॉट परमानेंट, ठीक है, इट्स अ टेम्परेरी, कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं। एग्जैक्ट मिनट आई थिंक 30 मिनट्स रहता है या कुछ सेकंड्स रहते हैं, मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ। तो उसके बाद वो फ्लश आउट हो जाता है। जैसे मैक टेबल भी आपका, अगर आप उसका मैक्सिमम एज आउट टाइम रहता है 5 मिनट, अपने 360 सेकंड रहता है ना आई थिंक, 300 सेकंड्स। सेकंड रहता है। तो अपने आप वो फ्लश आउट हो जाता है ना। इस तरीके से ये भी फ्लश आउट हो जाता है सेशन। अगर आप इनएक्टिव रहोगे बहुत देर तक, कोई आपके अंदर कुछ भी नहीं चला, तो कैसे टेबल और सेशन टेबल होता है वो फ्री हो जाता है, तो आपकी मेमोरी बनेगी ही नहीं। जब तक फ्लो चल रहा था तो चलिए, यूजर तो कभी तो घर जाएगा कभी तो सोएगा, 24 घंटा तो काम करेगा नहीं। अगर 24 घंटे काम करने वाला होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, यूज होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतने सेशन के पास होते हैं। तो दो चीजें कंसिडरेशन आपको रखनी पड़ेगी। एक तो आपको हार्डवेयर आपको सपोर्ट वो रखना पड़ेगा जिसमें आपको बेसिकली कितना आपको सेशन यूज होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन कैसी है, कितने यूजर्स हैं, क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो हर एप्लीकेशन के लिए मान के चलो कि एक सेशन बना, 2 सेशन बना, तो आप ऐसा तो है नहीं कि लाखों एप्लीकेशन एक साथ यूज करेंगे। एक यूजर बैठा है तो कितना एक टाइम में यूज करेगा, 2 4 5 10 एप्लीकेशन यूज कर लेगा, 20 एप्लीकेशन यूज कर लेगा। तो आपको 100 यूजर हैं तो कितने कर लेंगे, 2000 4000 5000 कर लेंगे। तो इतना तो कैपेसिटी रहती है फायरवॉल्स में, दे कैन हैंडल। एंड ऑल्सो दिस इज नॉट परमानेंट सेशन। ठीक है सत्यम जी, क्लियर? सर जैसे उसका 1 मिनट बाद फिर से एक मिनट सत्यम जी, क्लियर आपका? 1 मिनट आते हैं आपके पे, एक मिनट आते हैं। सत्यम जी क्लियर हुआ आपको पहले? हाँ सर, ये तो सर क्लियर हो गया, लेकिन हाँ। सर इसमें एक और भी, जैसे ये पर सेकंड के हिसाब से आप बता रहे हैं, जैसे 5 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए रहा और कभी वो गया तो वो सेशन हट जाएगा, न्यू रिप्लेस हो जाएगा। सर देखिए, नेटवर्किंग में जो सर डिवाइस है, सिक्योरिटी इज द मेन हब, मतलब सभी राउटिंग स्विचिंग से अगर माने तो ये मेन चीज है। क्योंकि अगर अगर इसका यूज ही किया जाता है कि अगर कोई अनवांटेड पर्सन अगर हमारे नेटवर्क में एंट्री कर रहा है तो उसके बारे में हमको एक नॉलेज हो जाए। तो उस चीज के लिए अगर वो उतने देर में अगर वो उसको हटा देगा, मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी कुछ है, तो अगर अगर हम उसको उसको टारगेट करना होगा कि वो कौन हिट किया है, कुछ किया है, तो उसके लिए फिर क्या रहेगा सर, कि भाई डेटा तो कहीं स्टोर। हाँ हाँ है, आपके पास डेटा है, उसके लिए लॉग्स बनते हैं, उसके लिए लॉग्स बनते हैं। वो लॉग आपके फाइल में स्टोर रहता है, आप कभी भी चेक कर सकते हो। आप उसका टाइम बहुत लंबा होता है। सेशन क्लियर हो जाएगा लेकिन लॉग्स होते हैं, वो लॉग्स आपके फाइल में स्टोर होते हैं। मैं आपको 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट ना। मदन जी आई थिंक कुछ पूछ रहे थे, एक एक करके मैं सबका क्वेश्चन लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ही लोग का पूरा सेशन है। तो मैं सत्यम जी को थोड़ा सा समझा कर इनको कन्विंस कर दूं तो फिर मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। अरे यार इसको क्या हो गया। तो हर एक फायरवॉल जो होती है सेशन तो बनाती ही बनाती है, बस साथ में क्या होता है कि दे ऑल्सो स्टोर द लॉग्स। सो लॉग के लिए जैसे मैं फायरवॉल में गया, अभी लॉग इन करता हूँ। तो हमारी फायरवॉल की आईपी है 192.168.1.1। सो यहाँ पे गया, HTTPS किया मैं यहाँ पे।
एक बार लॉगिन हो जाए, सो विल सी। ठीक है, सो जो भी फायरवॉल आप सेशन टेबल बनता है तो वो सेशन टेबल में दिखाऊंगा आप लोग आगे चल के। उसके अलावा क्या होता है, जब मॉनिटर, एक मॉनिटर टैब यहाँ पे देखें आप लोग, तो मॉनिटर टैब पे जब क्लिक करेंगे, थोड़ा सा एक बार रेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम फायरवॉल, तो हो गया आई थिंक। तो जब भी आप मॉनिटर टैब में क्लिक करें तो यहाँ पे ट्रैफिक डेटा रहता है। ये डेटा आपका रहता है बाय डिफॉल्ट, ये आपका एक इसकी एलोकेटेड मेमोरी रहती है 1 GB 500 MB। तो वो जब तक फुल नहीं होती है तब तक वो स्टोर रहती है, या आप उसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वाइप आउट, ये महीनों में रहती है, 2-4 महीने रहती है, आपका डेटा उसमें पड़ा रहता है। ठीक है, तो वो इमीडिएट खत्म नहीं हो। ठीक है सत्यम जी, तो आपको लॉग में आगे चल के मैं दिखाऊंगा आप लोग। यस क्लियर? सर। हाँ, अब मदन जी कुछ पूछ रहे थे आप, आई थिंक कौन पूछ रहे थे दूसरा कोई? हाँ जी मदन जी बताइए बताइए। सर तो आपने बताया कि जब कोई वो पैकेट भेजता है या कुछ वो ट्रैफिक जाता है तो वो उसका सेशन बना लेता है। हाँ तो ठीक है, आपने बताया कुछ सेकंड्स का टाइम रहता है, तो उसके बाद मैं मान लो कि 10 सेकंड बाद फिर से भेजता हूँ, फिर से भेजता हूँ 10 सेकंड, क्या हर बार वो नया सेशन बनेगा? नहीं 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 नहीं, वो आई थिंक बाय डिफॉल्ट सेशन आई टाइम रहता है 30 मिनट रहता है आई थिंक। मेरे को चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, अभी स्किप हो गया दिमाग से। अभी मैं देख लेता हूँ, हर एक डॉक्यूमेंटेशन देख कर मैं बता दूंगा कल के सेशन में आप लोग को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इतनी जल्दी फ्लश आउट नहीं होता है। इट इज गोइंग टू, मान के चलो 30 मिनट, 30 मिनट सेशन आपका रहेगा, तो 30 मिनट के बाद अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो दो सेशन इज गोइंग टू फ्लश आउट, उससे पहले नहीं होगा आपका। तो अगर आपका एक्टिव सेशन है, आप लगातार बात कर रहे हो, राइट, तो आपका सेशन आपको बनेगा नहीं। एक बार बन गया तो बन गया, आपको उसी पे फ्लो रहेगा। जैसे आप लगातार फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, 5 घंटे तक आपने किया, तो 5 घंटे तक एक बार सेशन बना, वही 5 आवर्स तक आपका सेशन रहेगा। बट अगर आपने 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे नहीं एक्सेस किया तो आपका सेशन वो वाइप आउट हो जाएगा। फिर आपका जब दोबारा एक्सेस करोगे facebook.com तो फिर से आपका नया सेशन बनेगा। सर बाय डिफॉल्ट क्या इसको टाइमिंग इसका हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। टाइमिंग बाय डिफॉल्ट आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो हमारा, अब जो मैं आता हूँ, क्वेश्चन था हमारे एक कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन का, आई थिंक किसने पूछा था, मैं भूल गया। ठीक है, डिफरेंस कंट्रोल हाँ, प्लेन डेटा उसमें। हाँ ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन, यहाँ तक हमारे तो क्लियर हो गया कि हमारा क्या होता है, सिंगल प्लेन सिंगल पास सॉफ्टवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। अब आपको बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर 2 डेडिकेटेड सीपीयू होते हैं, एंड दिस इज द यूनिक थिंग, ये आपको किसी हार्डवेयर में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पालो अल्टो में ही मिलेगा। ये सिर्फ पालो अल्टो में ही मिलेगा कि आप अगर डैशबोर्ड पे जाओगे तो डैशबोर्ड पे ही आपको यहाँ पे सिस्टम रिसोर्स देखोगे तो आपको एक मैनेजमेंट कंट्रोल प्लेन के लिए, मैनेजमेंट के लिए आपको अलग सीपीयू मिलेगा, डेटा प्लेन के लिए आपको अलग सीपीयू मिलेगा। तो मैंने बताया था कि जब भी आपसे कोई डिफरेंस पूछा जाए कि इन दोनों सीपीयू का क्या काम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीपीयू क्या करता है और ये सीपीयू क्या करता है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि जब आप इस आर्किटेक्चर को समझते हो तो इन सीपीयू के बारे में अगर समझते हो तो बहुत क्लियर सी डेफिनेशन है इनके, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप बात करो कंट्रोल प्लेन सीपीयू की, जो आप मैनेजमेंट प्लेन की बात भी कर रहे हो, सेम ही चीज होता है, और आपका दूसरा होता है डेटा प्लेन का सीपीयू। ठीक है, तो वो जो कंट्रोल प्लेन का सीपीयू होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका एक काम होता है मैनेजमेंट का, दूसरा काम होता है कॉन्फ़िगरेशन का, तीसरा काम होता है उस पर लॉगिंग्स का और रिपोर्टिंग्स का। तो 4 फंक्शंस होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप समझोगे करके। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप फायरवॉल को कैसे एक्सेस करते हो, कंसोल से आप उसके HTTPS से एक्सेस करते हो, या आप उसको किसी तरह से पट्टी सेशन से एक्सेस करते हो, तो वो सारा आपका ये सब मैनेजमेंट प्लेन का काम होता है। कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, जैसे आप जाकर कोई पॉलिसी बनाया आपने फायरवॉल पे, कोई पॉलिसी बनाया, किसी तरह का आपने चेंजेस किया, तो सब कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड काम होता है, वो भी सारा मैनेजमेंट सीपीयू के अंदर ही होते हैं, कंट्रोल प्लेन सीपीयू इसको बोलते हैं, वो भी उसी के अंदर होते हैं। फिर आप लॉगिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग करना। लॉगिंग मतलब क्या कि फायरवॉल से कोई किसी तरह का रिपोर्ट पुल करना है, कोई लॉग देखना है, जैसे मैं मॉनिटर टैब में गया तो सब लॉग देखना है, सारे लॉग्स होते हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी होती है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो भी आपका मैनेजमेंट प्लेन का सीपीयू ही करता है। अगर इसमें से आपको रिपोर्ट पुल करना है तो रिपोर्ट आपको पीडीएफ में निकल जाती है नीचे, तो मैं दिखाऊंगा आगे चल के कि यहाँ से आपको पीडीएफ में रिपोर्ट निकल जाती है,
और उस पीडीएफ की रिपोर्ट से आप अपने मैनेजर्स को, अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, अपने सीनियर्स को शेयर कर सकते हो, या आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, रिपोर्ट सारी निकल जाती है, तो वो भी होती है। तो बेसिकली जो आपका कंट्रोल प्लेन या मैनेजमेंट प्लेन सीपीयू है, दिस सीपीयू हैविंग द 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन इज द मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग। बहुत क्लियर है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब डेटा प्लेन का बात करते हो तो बाकी जितनी भी चीजें रह गए, जैसे नेटवर्किंग का, राउटिंग चेक करना, राइट, देखो यहाँ पे नेट का, क्यूएस का, राउट लुकअप, मैक लुकअप, नेटवर्क लेयर कम्युनिकेशन, जो आपका लेयर 4 होता है, ये सारा काम करता है आपका डेटा प्लेन का नेटवर्क प्रोसेसर। नेटवर्क प्रोसेसर क्या होता है? देखो यहाँ पे नेटवर्क प्रोसेसर मैंने दिखाया था आपको कि आपका डेडिकेटेड प्रोसेसर जो होता है ये रहता है। तो नेटवर्क का प्रोसेसर आपका यहाँ पे देखिए, ये वाला प्रोसेसर है आपसे। तो ये प्रोसेसर आपका पूरा नेटवर्क का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सिक्योरिटी प्रोसेसर होता है। सिक्योरिटी प्रोसेसर काम क्या होता है कि उसका काम होता है कि आपके सिक्योरिटी टास्क, जैसे एसएसएल डिक्रिप्शन, हम पढ़ेंगे एसएसएल डिक्रिप्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर कंसल्टेंट लेयर 3 प्लस इंजीनियर बनना है तो यू शुड नो व्हाट इज एसएसएल डिक्रिप्शन, आईपीसेक डिक्रिप्शन कैसे काम करते हैं। तो ये जो डिक्रिप्शन वाले जो काम होते हैं वो आपका सिक्योरिटी प्रोसेसर करता है। अब सिक्योरिटी प्रोसेसर एंड सिक्योरिटी मैचिंग प्रोसेसर में डिफरेंस होता है। सिक्योरिटी प्रोसेसर जो इसमें डेडिकेटेड है वो आपका सिर्फ 2 टास्क के लिए, एसएल डिक्रिप्शन और आईपीसेक डिक्रिप्शन के लिए। लेकिन जो सिक्योरिटी मैचिंग प्रोसेसर होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका सारे कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट वेरिफिकेशन, जिसमें इसमें 2 ही चीज दे रखा है, वल्नरेबिलिटी एंड वायरस, बस इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। तो आपका अगर जाओगे कंटेंट में तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, डॉस प्रोटेक्शन, वाइल्ड फायर एनालिसिस, ये सारे सिग्नेचर्स को चेक करता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कंट्रोल प्लेन जो हमारा होता है उसके पास लिमिटेड फीचर्स होते हैं, मतलब लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट, लॉगिंग, रिपोर्टिंग्स एंड आपका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है। बट रेस्ट ऑफ जितना भी काम होता है दैट इज गोइंग टू डन बाय द आपका control plane, data planes processor. देखो Palo Alto Network Next Generation Firewall offer the processor dedicated to a specific function that work in a parallel. यहाँ भी लिखा हुआ है the data plane is the high end model contain 3 types of the processor CPU connected to the high speed 1 Gbps buses. इनके जो इंटरनल कनेक्टेड होते हैं, जो बस केबल से कनेक्टेड होते हैं, देखिए जो 10 Gbps के जो कनेक्शंस होते हैं बहुत ही हाई स्पीड होते हैं, इंटरनली जो कनेक्शंस होते हैं, तो फटाफट एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करते हैं, आपस में चेक करते हैं और अपना फटाफट आउटपुट दे देते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा जो बात कर रहा है द कंट्रोल प्लेन इज रिस्पांसिबल सच ए टास्क, जो मैंने बताया आपका, उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। दिस इज द SP3 आर्किटेक्चर। और इसमें होता क्या है कि आपका जब भी पैकेट आता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग प्रोसेसिंग एक टाइम पे होती है, और देखो सब कुछ होने के बाद आपका फाइनली पैकेट अलग अलग चेक होने के बाद ये बाहर चला जाता है। इस तरीके से आपका पूरा पैकेट प्रोसेसिंग होता है। सर जैसे आपको पॉलिसी, हाँ बताइए। आप एक बार वो फायरवॉल कंसोल पे एक बार दिखाइए, जो फायरवॉल कंसोल आप दिखा रहे। CLI यू मीन CLI? डैशबोर्ड। अच्छा डैशबोर्ड, हाँ गया। यहाँ पे देखिए सर, मैनेजमेंट CPU और कंट्रोल प्लेन CPU लिखा है, डाटा प्लेन CPU। सो यहाँ पे कंट्रोल प्लेन किसके अंदर में जाता है? मैनेजमेंट CPU के अंदर में जाता है। मैं हाँ सेम ही मैनेजमेंट CPU कंट्रोल प्लेन, वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा है, इसी के बारे में लिख रहा है, इसी के बारे में लिख रहा है आप, इसी के बारे में लिख रहा है। तो आप बोल रहे थे इन केस ऑफ VLC CPU, in case of management CPU goes down, we won't have any impact on data plane. But here, if the control plane is the part of management CPU, so if the management CPU is down, I think the firewall will crash, the brain will be down. नहीं, that is not going to be down. आप समझिए बात को, जब मैनेजमेंट डाउन होगा तो ना ही इससे आपकी राउटिंग चेक हो रही है, आप सिर्फ फायरवॉल का एक्सेस लॉस्ट कर दोगे। नहीं, वही बोला ना, मतलब अभी कंट्रोल प्लेन, वही मैं पूछा आपको, अभी कौन किसके अंडर में वो जा रहे हैं कंट्रोल प्लेन एक्टिविटी। आप वहाँ पे कंट्रोल प्लेन वो बोल रहा है कि इट्स मैनेजमेंट टास्क, यहाँ पे जो लिखा है देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए डेटा प्लेन है ना, यहाँ डेटा प्लेन है, इसका जो नेटवर्क प्रोसेसर है यहाँ पे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग। जो आपकी जो कंसर्न है मेन ना, राउटिंग लुकअप के लिए, तो आपका जो मैनेजमेंट प्लेन वाला CPU है, जिसको यहाँ कंट्रोल प्लेन यहाँ बोला गया है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आपका कंट्रोल प्लेन का मतलब मैनेजमेंट प्लेन ही यहाँ पे। इसमें सिर्फ 4 ही टास्क होंगे। अगर ये डाउन भी हो जाता है तो क्या नहीं कर पाओगे आप उस फायरवॉल का एक्सेस नहीं ले पाओगे,
आप उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, आप कोई उससे रिपोर्ट नहीं ले पाओगे, ना कोई उसके लॉग्स ले पाओगे, सिर्फ चार्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो पैकेट है वो प्रोसेस हो रहा है, कोई राउटिंग का पैकेट आया, कोई राउट लुकअप करना है, कोई मैक लुकअप करना है, कोई डिक्रिप्शन करना, वो सब होते रहेगा, वो नहीं बंद होगा। गॉट इट। एक्चुअली इसमें जो कंट्रोल प्लेन का टास्क है, जो राउटिंग, ये यहाँ पे डाटा प्लेन पे हो रहा है। हाँ, उसके लिए डेडिकेटेड, वही वही इसीलिए ना 3 प्रोसेसर है इसके अंदर, डेटा प्लेन के अंदर डेडिकेटेड 3 प्रोसेसर इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो जो राउटिंग वाला पार्ट है डेटा प्लेन के अंदर ही डाल दिया यहाँ पे, ओके इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पे, इसीलिए अलग हो गया। जैसे आपने बताया कि राउटर में सिंगल सीपीयू रहता है, हाँ, और उसके अंदर कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन रहता है, दोनों ही रहते हैं जी। और उनमें से एक डेड भी हो गया तो वो पूरा राउटर का सीपीयू बंद कर देगा। हाँ, इसमें अगर एक डेड हो गया, अगर राउटर का सीपीयू डेड हो गया तब सब कुछ गया। इसमें अगर ये डेड हो गया तो आपका सिर्फ 4 चीजें जाएंगी, अगर ये डेड हो गया तो आपके सब कुछ चला जाएगा, लेकिन आपका रिमोट एक्सेस रहेगा अभी भी आपके पास। आप फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हाँ, फिर से आप कुछ उसमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, डीबग लगा सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। बट स्टिल वी मतलब हमको टैग केस, इन दैट केस हम रेज करेंगे भी, तो आई एम नॉट श्योर हाउ दे विल गोइंग टू टेक देम एक्सेस if the management risk goes down, right, you're talking. yeah. हाँ, तो फिर उस केस में तो फिर आई थिंक देयर इज अ लास्ट ऑप्शन, वी हैव टू टेक अ कंसोल, अगर वो चल रहा है तो। हाँ, दैट इज अ लास्ट रिजॉर्ट, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, सर फायरवॉल एक्सेस कैसे कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। अभी आई थिंक आपने कल ज्वाइन नहीं किया था क्लास में, उसी के बारे में कल का सेशन का मैं आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देता हूं। तो उसमें मैंने कल यही बताया था कि फायरवॉल कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी नया फायरवॉल होता है तो मैंने कल लाइव सेशन था, आपको मैं लिंक शेयर कराता हूँ, एक बार अभिषेक सर से कनेक्ट कर लीजिएगा आप। आई थिंक नंबर होगा आप लोगों के पास, तो ही विल शेयर द लिंक। सो आप उसमें पूरा सीख जाएंगे कि कैसे एक ब्रांड न्यू फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कल के सेशन में हमने ये पूरा डिस्कस किया था, तो आपको पूरा वहां पे एक्सेस मिलेगा। लैब का भी अभिषेक सर बता देंगे कैसे मिलेगा आपको। तो आई थिंक हमारा जो SP3 आर्किटेक्चर आई थिंक सबको क्लियर है। मतलब है टॉपिक बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा तो नहीं बोल सकते बट इट्स हैविंग लाइक इसके पास आपको मतलब कंप्लीट SP3 में सर ओनली SP3 मतलब 2-4 टाइप के क्वेश्चंस क्या इंटरव्यूज या फिर जैसे अब इंटरव्यू देने जाएंगे, सो दे विल स्टार्ट कि अच्छा आप बोलते हो कि पालो अल्टो, आप किसी में लिखा होगा कि पालो अल्टो मुझे आता है, मैंने पालो अल्टो पे काम किया है, तो they will ask why you use the SP3 architecture in the Palo Alto Firewall and what is the SP3 architecture in the Palo Alto Firewall। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या होता है, इसके फंक्शनलिटी कैसे काम करता है। जो चीज मैंने बताया आपको, आप अपने लैंग्वेज उसको बता सकते हो विद एग्जांपल। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि गिव द रियल टाइम एग्जांपल्स। आप इंस्टेड ऑफ की थियोरेटिकली आप बताने जाओ, समझाने जाओ, आप हमको ऐसे बताओ कि देखो जी आप हमें यहाँ जाते हैं रेलवे स्टेशन मेट्रो पर, तो वहाँ पे जो हमारा स्कैनिंग प्रोसेस होता है उस तरीके से हमारा होता है। देन यू कैन मोल्ड द थिंग्स इन योर लैंग्वेज, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि किस तरीके से पैकेट। कैन आई यूज द एग्जांपल? हाँ बिल्कुल यूज करते हैं, रियल एग्जांपल्स हैं ये, एग्जांपल्स लोग देते हैं, दीज आर द रियल एग्जांपल्स। इसलिए मैंने एग्जांपल देके, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से, दीज आर द रियल टाइम एग्जांपल्स। और लेमन हर किसी को ऐसे समझाओगे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। इस पे यही सेम प्रोसेसिंग यूज होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप यूज कर सकते हैं इसको, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो, उसको हमें पैकेट फ्लो हमें डिस्कस करना, बट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द मंडे, नॉट आज हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि इट्स डन फॉर टुडे। आप लोग जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं अभी सर। हाँ हेलो, ये कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं क्या इसमें पालो अल्टो में? देखो इंटरकनेक्ट तो सारा कुछ रहता है, बिना कंट्रोल प्लेन का डेटा प्लेन पे कोई रिक्वेस्ट जाएगी नहीं। सो वो जैसे आप यहाँ देख रहे थे ना, तो बिना कंट्रोल प्लेन से डेटा प्लेन आपका मतलब इंस्ट्रक्शन जाएगा नहीं। मतलब कहने का मतलब कि आपस में जो कंट्रोल CPU होता है एक तरह से, मतलब अगर वो डेड भी हो गया राइट, तो उसका जो पैकेट का जो आपस में ASICs होते हैं तो वो प्रोसेस करते रहते हैं, राइट। क्योंकि उसका क्या होता है कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जो एक्चुअल इंटरफेस जब पैकेट आता है तो आपस में सारा ASICs बैक प्लेन पे सारा कनेक्टेड रहते हैं। तो जो पैकेट आपका आता है तो जो कंट्रोल वाला होता है वो कंट्रोल वाला हैंडल करता है, जो कंट्रोल प्लेन करना होता है। जो डेटा प्लेन का होता है वो डेटा प्लेन का होता है। तो होता क्या है कि जैसे आपका केबल होता है, केबल आपके एक फायरवॉल पे लैंड किया, अब इस फायरवॉल के इंटरफेस के पीछे सारे जितने भी कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन के जो ASICs होते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर जो मेरा मास्टर CPU है समहाउ, राइट, जो मास्टर CPU जिसको एलोकेट करना है, अगर वही डेड हो गया
तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लेते हैं सिर्फ आपका मैनेजमेंट प्लेन वाला सीपीयू डेड हो गया, तो फिर आप मैनेजमेंट उसका नहीं कर सकते हैं, बट आपका डेटा प्लेन आपका एज इट इज चलते रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका बड़ा ही डिटेल, हर एक फायरवॉल का ना जो आर्किटेक्चर होता है बड़ा ही डिटेल वे में होता है, कि मतलब कि इस तरह से सीपीयू रैम डिजाइन होते हैं कि हर एक स्पेसिफिक टास्क का एक अलग सीपीयू, या मतलब छोटे छोटे टास्क का 2-3 टास्क का मिला के एक अलग सीपीयू, अलग रैम रहता है, और वो इंटरलिंक सारे आपस में पीछे से कनेक्टेड रहते हैं A6 के थ्रू। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके टोटल 3-4 सेक्शंस होते हैं, राइट। अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग डीमंस होते हैं, अलग अलग चिपसेट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं, एंड देन फाइनली आपका पैकेट आपका बाहर चला जाता है। ठीक है। और सर एक दूसरा हेलो। क्वेश्चन था। सर ये पालो अल्टो फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन कौन से प्लेन में स्टोर रहते हो? फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन से प्लेन में स्टोर रहेगी वो, मतलब जो हम कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉन्फ़िगरेशन वो सारा मैनेजमेंट प्लेन में स्टोर रहता है, सारा मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आप सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन में करते हैं, तो सारा सीपीयू मैनेजमेंट वाला ही आपको उसको इंटरेक्ट करता है, कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है। ओके, यस। हेलो हेलो। हेलो, यस यस, टेल मी। जी जी, मुझे हाँ ये बताइए। कंफर्म करना है, ये जो आप आईपी सेक टनल और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड राउटिंग, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा? ये सारे प्रैक्टिकल हम कराएंगे सर, ये सारे प्रैक्टिकल जब हम, अभी तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्लास का बस आप लोग का थ्योरी से बस 2 ही क्लास होती है, थ्योरी की पैकेट फ्लो। इसके बाद जितने भी सेशन है सारे प्रैक्टिकल हैं, तो मैं आप लोग एक एक करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि आपका कैसे लैब, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही आपका मॉड्यूल 1 खत्म होगा, तो हम आपको सीधा इस मॉड्यूल में लैंड कराएंगे कि हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम कैसे फायरवॉल कॉन्फ़िगर होती है वो मैंने सिखा दिया है, बाकी चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे होता है। उससे पहले आपको मॉड्यूल 3 में आपको यहाँ पे लैंड कराएंगे, आपको सिक्योरिटी जोन्स बताऊंगा, लेयर थ्रू कैसे फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेयर 3 कैसे होता है, वर्चुअल वायर कैसे होता है, टैप मोड कैसे होता है, सब इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, डीएससीपी कैसे होता है, वर्चुअल राउटर, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन का ही पूरा मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन का है, शुरू के बस ये 2 क्लास थ्योरी है। साइट टू साइट वीपीएन जो कनेक्शन होगा वो क्लाउड से होगा कैसे? साइट टू साइट वीपीएन आपका जो यहाँ पे होगा, आई थिंक आई बिलीव आई गॉट वन रिक्वेस्ट कि यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एजोर से कनेक्टिविटी कराना है कैसे, वो आपको सीखना है, राइट। जी जी, और हाँ क्लाउड सो और हाँ क्लाउड। हाँ, यहाँ पे आपका एजोर वाला जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू कवर सेपरेट, ठीक है। उसका मैं वीडियो आपके लिए अभिषेक सर ने बताया होगा, विल अरेंज फॉर यू, राइट, कि कैसे एजोर से कराते हैं, राइट। और अगर जरूरत होगी तो विल अरेंज द सेशन फॉर यू आल्सो। बट यहाँ पे जो होगा साइड टू साइड वीपीएन, दैट इज द कंप्लीट इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट, कि 2 साइट्स होंगी अलग अलग, उनके बीच में फायरवॉल्स होंगी और बीच में इंटरनेट होगा, वहां पे हम करके दिखाएंगे। सर हाँ बताइए। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो अभी आज हमारा मतलब सेकेंड या थर्ड डे है, आई थिंक थर्ड डे है, तो ये जो सेशन हमारा चल रहा है, तो पर डे सेशन को सेंड करने में हम लोग के गूगल ड्राइव पे, मतलब हमारा ही सेशन हमको मिलेगा ना, दूसरे का तो नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल आपका ही सेशन आपको मिलेगा और हर रोज अपने आप अपडेट हो जाएगा। आप लोग को बस ड्राइव चेक करना, कुछ नहीं करना, आप लोग अपने आप ही ड्राइव में चला जाएगा, सब ऑटोमेटेड है, करने वाले हाउ जैसे मच सेशन खत्म होता है सर टाइम, सब चला जाए। हाउ मच टाइम सर, कितना टाइम एक सो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, ये ड्राइव, ये जो रिकॉर्डिंग है ना जूम की, ये जूम क्लाउड पे पहले स्टोर होती है, राइट। उसको स्टोर होने के बाद इसकी लेंथ पे ये 8 से 12 घंटे लगता है प्रोसेस होने में। तो ये प्रोसेस होकर फिर रिकॉर्डिंग हमें मिलती है, फिर हम अपलोड करते हैं, क्योंकि इमीडिएट रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि आई थिंक ग्लोबल, हाँ 2 डेज। नहीं, नेक्स्ट डे, आज क्लास हुआ तो कल आपको मिल जाएगा, कल एनी हाउ आपको मिल जाएगा। ओके सर। हाँ कल आपको सेशन मिल जाएगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है इसके लिए जो पार्टिसिपेंट हैं? आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जाके जितने हमारे एक्स लोग हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू गाइज कैन हैव अ डिस्कशन। तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग को मैं लिंक दे देता हूँ, ये ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे एक्स स्टूडेंट ही हमारे हैं, जितने भी हमारे या तो करंट बैच के या तो फिर प्रीवियस बैच के हैं, तो यू गैज कैन ज्वाइन, और वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग टाइप कर सकते हैं। मैं भी उस ग्रुप में हूँ, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, हम जो हाँ। ये प्रैक्टिकल करने वाले वो जो मतलब CI का CLI से करेंगे या GUI से, मतलब सब जो कुछ भी GUI से होगा, GUI से भी होगा, CLI से बहुत कम होगा, क्योंकि CLI Palo Alto में बहुत कम यूज होता है, तो आप लोग को सब GUI पे ही करना है।
सर सर जो परसों की क्लास थी कल मतलब कल की जो क्लास थी सर, उसमें आपने जीओआई और सीएलआई के बीच में कुछ बताया था। तो मतलब सर मेरे से ये पूछना था कि जब टोटल काम हम लोग जीओआई से ही करते हैं, क्योंकि वो राउटर तो है नहीं कि कमांड पे आईपी डाले, ये सब तो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि देखना ही पड़ेगा इसमें। तो ये बोला सर कि इस पर वाई मतलब क्यों अपन कोई एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन के कारण हम लोग सीएलआई यूज करते हैं, या फिर कुछ बेनिफिट्स उसका कुछ अलग है? देखो होता क्या है सत्यम जी, कि आप सब कुछ जीओआई से कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई ब्रांड न्यू फायरवॉल है, राइट, ठीक है, आप उस पे मान के चलो मैनेजमेंट आईपी एड्रेस नहीं है पड़ा हुआ पहले से, आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको कंसोल चाहिए ना, ठीक नहीं चाहिए, यस सर। तो आपको सीएलआई लेना पड़ेगा। एक हाँ। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे तरीका ये होगा कि मान के चलो कि फायरवॉल आपकी ना, जैसे राउटर आपका कई बार क्या होता है कि आपका रोमन मोड में चला जाता है, हाँ या फायरवॉल फी आपका कई बार हैंग स्टेट में चली जाती है, या फिर वो अपने ऑटो स्टार्ट मोड में चली जाती है, तो उस केस में भी सीएलआई की आपको जरूरत पड़ती है, राइट। तो उसमें आपको रिकवरी के लिए सीएलआई की जरूरत पड़ती है। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो गया कि आपको डीबग्स कई बार लेने पड़ते हैं, डीबग्स लेने पड़ते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा लाइव डीबग्स कैसे लेते हैं, उसमें सीएलआई की जरूरत पड़ती है, राइट। कुछ ऐसे पुराने आईओएस होते हैं जिसमें पुराने आईओएस का मतलब कि आपका 9.0 की बात कर रहा हूँ, 10.0 में तो फीचर अभी आ गया, उसमें कुछ आपको टेस्ट कमांड्स होते हैं, राइट। कुछ टेस्ट कमांड्स होते हैं, उस कमांड्स के थ्रू क्या कर सकते हो कि आप अपने आईपी सेक टनल्स को वेरीफाई कर सकते हो, आईपी सेक आपके अप है डाउन है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। या कुछ पॉलिसी को आपको रूल चेक करना है बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो सब चेक करते हो। सीएलआई ट्रबल शूटिंग में काफी हेल्प करता है, आपका बहुत हेल्प करता है। अच्छा मीन्स बाकी सर कुछ हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ओनली अवेलेबल ऑन सीएलआई, है ना? ऐसा कहने का मतलब ऐसा पार्शियली ट्रू है, क्योंकि डीबग ही ऐसा एक चीज है कि जिसको हम सीएलआई से मतलब करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें, डीबग हो गया, टेस्ट वीपीएन कमांड हो गया, कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी पैन ओएस 10 के अंदर वो काफी चीज उसको फिल कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट 1% चीज आप बोल सकते हैं सीएलआई पे डिपेंडेंट है, बाकी 99% चीजें आपके जीआई पे हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए सीएलआई की कमांड आप देखोगे बहुत सारी चीजें होती हैं सीएलआई के अंदर भी कि जो आप कर सकते हो, आपको होना आना भी चाहिए थोड़ा। सीएलआई कमांड्स आप देखोगे तो दुनिया भर के कमांड, ये नहीं है, एक मिनट रुको आप लोग, सीएलआई 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 यहाँ पे, तो आपका अलग अलग सेक्शन है, देखो मजा आता है। जैसे आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग करना है तो ये सब कमांड चला कर सकते हो। डेटा प्रिंट कर देखना है तो ये लॉग्स देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो जनरल पैकेट सीएलआई कमांड। आपका डीबग चलाना तो यहाँ से देख सकते हो। तो डीबग उबग जितने कमांड होते हैं सब सीएलआई में चलते हैं। फिर आपको कुछ कुछ जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन देखने हैं तो आप जीयूआई से भी देख सकते हो, सीएलआई से भी देख सकते हो। परफॉर्मेंस देखना है वो भी देख सकते हो, डायनेमिक अपडेट्स देखना है तो ये सब भी देख सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन उसने एक मतलब समरी बना के रख रहा है कि आप सीएलआई चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही केस में जरूरत पड़ेगा। हाँ। 1% आप मान के चलो। सर तो कुछ केस जो आप बताएंगे तो वो मतलब ये कि हम लोग को बताया कि ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये आपको सीएलआई को ही यूज करना पड़ेगा, हाँ मैं ताकि बताऊंगा ना, बहुत तभी तो सारे मैं बता, हाँ तो मैं बहुत बता सारे तो रहा हूँ। हाँ देखिए, जैसे मैंने फायरवॉल को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया सीएलआई से करके दिखाया था ना आपको हाँ कि हाँ बिल्कुल हाँ ब्रांड न्यू फायरवॉल है तो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, तो वैसे ही छोटी छोटी चीजें आपको मैं डीबग करने सिखाऊंगा, राइट। हाँ। आपको जब आईपी से कराऊंगा तो कैसे सीएलआई से हम ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं वो मैं दिखाऊंगा करके ना आगे, तो आप लोग उसको नोट कर, तभी बोलता हूँ कि जब मैं सीएलआई पे कमांड चलाऊंगा तो उसको आप लोग लिख लेना, मैं बता भी दूंगा कि इसको नोट कर लो, ये काम आएगा। ठीक है सर। और बाकी चीजें आप सब कुछ कर सकते हो जीयूआई पे, आपको जरूरत नहीं है। 2 4 5 चीजें ही बताऊंगा सीएलआई के जो आपको यूज आएगी अलग अलग सेक्शन में। रिक्वायर्ड होगा, हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, बाकी चीजें आपको जीयूआई पे होगा सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ जब बताइए। हम रिमोट का जो ये है पालो अल्टो फायरवॉल है हम एक्सेस करते हैं वो रिमोट से, तो हम मतलब वो हमारे लैपटॉप से करेंगे या पेडोरामा से करेंगे, कैसे करेंगे? अच्छा, मतलब ये लैब वाली बात कर रहे हो, रियल में बात कर रहे हैं आप? रियल में। अच्छा रियल में, तो रियल में जो आपकी पालो अल्टो फायरवॉल होती है तो आपके पालो अल्टो फायरवॉल कंपनी के अंदर कहीं लगी होगी, राइट। नहीं वो रिमोट लोकेशन में है तो। मतलब कहीं भी डेटा सेंटर में लगेगी पालो अल्टो फायरवॉल, ये लगी है ना, पालो डीसी में लगा होगा, राइट। हाँ डीसी में है तो आ- हम कैसे एक्सेस ये करेंगे? आप आईएसपी में हो, आप कहाँ बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो या घर में बैठे हो, ये बताओ। ऑफिस में। ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पे आपका लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है। सो यू गोइंग टू कनेक्ट दिस आईएसपी वाया दिस, राइट, ये ऑफिस का लैन है। तो इस पालो अल्टो फायरवॉल की रीचेबिलिटी आपके ऑफिस की लैपटॉप तक होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ से बैठ के यहाँ पिंग करोगे तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, एल्स यू कैन नॉट डू एक्सेस। तो आपकी राउटिंग रीचेबिलिटी करनी पड़ेगी आपको।
नहीं मतलब वो जो हम जैसे गूगल क्रोम से एक्सेस कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे HTTPS हो और मैनेजमेंट हाँ आईपी। सेम आपका सिर्फ आपका पीसी से पालो अल्टो फायरवॉल का मैनेजमेंट इंटरफेस पिंग होना चाहिए, राउटिंग शुड बी देयर, देन यू कैन एक्सेस इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन ओके, एक्सेस मतलब इट। घर बैठे जो घर का जो लैपटॉप है उसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं वैसे तब सेम। VPN चाहिए है ना सर? हाँ तब VPN चाहिए हो, क्योंकि आपका तब राउटिंग रिचेबिलिटी कैसे करोगे आप, फिर प्राइवेट आपको नेटवर्क हो हाँ जाएगा। हाँ। प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। और तो सर पनोरमा का यूज क्या होता है फिर इधर जो एक्सेस करते हैं हम एक ऑफिस? एक मिनट में बताता हूँ आपको। एक आई थिंक एक हैंड रेज किसी ने किया था, आई थिंक हु वाज दैट, ओके ठीक है हाँ ऑलिवर, आई थिंक ही लेफ्ट। सो हाँ क्या पूछ रहे हैं आप, पैनोरामा का केस? नहीं मतलब जो हम रिमोट पालो अल्टो फायरवॉल है वो एक्सेस करते हो तो पनोरमा से भी करते हैं ना मतलब? हाँ पैनोरामा से भी करते हैं, विल कवर दैट पार्ट लेटर स्टेज, मैं बताऊंगा क्या होता है पैनोरामा इन डिटेल में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द सेशन हम पूरा चीज डिस्कस करेंगे। पैनोरामा का हमारा मॉड्यूल है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, यस पैनोरामा यस क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे। है सर। सो लेट्स कनेक्ट ऑन द मंडे, ठीक है। मंडे कनेक्ट करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी एंड विल अंडरस्टैंड द पैकेट फ्लो। तो कमर कस के आना आप लोग सब कुछ, ठीक है। पैकेट फ्लो में आप लोग को पूरा एक एक स्टेप समझना पड़ेगा, पैकेट फ्लो क्या होता है, कैसे चलता है, राइट। ओके सर एक हाँ लास्ट सर क्वेश्चन, एक हाँ बताइए। डिबग कमांड है हम लाइव एनवायरनमेंट में चलाते हैं क्या? हाँ चलाते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एंड यू हैव टू ट्रबल शूट, सो डिबग यू कैन अप्लाई, बट उसके लिए आपके बहुत अप्रूवल चाहिए होते हैं, राइट। डिबग बना है तो दैट इज फॉर लाइव एनवायरनमेंट, ट्रबल शूटिंग के लिए ही बना हुआ है, राइट। बट मैं आपको पूरा डिबग का पैकेट कैप्चर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, बट आप लोग चलाना मत जब तक आपके मैनेजर, आपके सीनियर मैनेजर और आपके क्लाइंट अप्रूवल ना देते हैं, वरना नौकरी जा सकती है, ठीक है। ओके ठीक है हाँ सर। ओके debug is not recommended in the live environment unless or until you really require to do that, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों चलाते हैं और कैसे चलाते हैं, वो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, इट्स माय गारंटी। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मुजामिल एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ सर, इसमें हम लोग लाइव जो क्या बोलते हैं अटैकिंग होती है वो देख सकते हैं सर लाइव, मतलब अरे सब मैं लाइव अटैक करके दिखाऊंगा सर, टेंशन मत लो, सारी लैब्स वो हमारी इस तरीके से डीडोस बने, सब लाइव, एवरीथिंग लाइव। अगर लाइव ना हो तो जस्ट आप बोल देना जो बोलना मुझे, सब कुछ लाइव यहाँ होगा, कुछ भी यहाँ पे अनलाइव नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने सब जुगाड़ कर रखे हैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, बहुत मेहनत किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सर तो एक लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट पहले मैं आप लोग मुजामिल को थोड़ा सा दिखा लूं। देखिए काली लिंक्स मशीन है, इस मशीन से आपको लाइव वल्नरेबिलिटी अटैक होगा, लाइव आपका डीडोस अटैक होगा, लाइव आपका एंटी स्पाईवेयर करके दिखाऊंगा मैं, लाइव वायरस आपको ब्लॉक करके दिखाऊंगा, लाइव डीडोस ब्लॉक करके दिखाऊंगा, सब कुछ लाइव अटैक होगा यहाँ से लाइव। आप लोग बिल्कुल पैकेट को देखोगे और फाइल कैसे ब्लॉक करती है, कुछ भी थ्योरी नहीं, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा, सब कुछ। So, आप लोग टेंशन लेंगे, यू गाइस आर राइट प्लेस, टेंशन मत लो आप लोग। सर ये क्वेश्चन मेरा, हाँ बताइए। सर जैसे हम राउटिंग करते हैं, किसी भी हम राउट करते हैं किसी नेटवर्क को हम, तो उसका मतलब है कि किस नेटवर्क को अदर्स कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं ना। अगर हम राउटिंग के बिना आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं कुछ भी, राउटिंग हाँ तो आपको। अगर जी जी अगर अगर हम कहीं गलत राउटिंग कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितने बंदे जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं, कितने सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं हमारे सिस्टम को। नहीं, राउटिंग से आप ये नहीं ट्रैक कर सकते हैं कि कितने बंदे एक्सेस कर रहे हैं आप सिस्टम को। उसके लिए आपको एक्चुअली क्या होता है, राउटिंग आपकी कनेक्टिविटी देता है, उसके लिए आपको फिर अलग अलग उसके अंदर फीचर होते हैं। जैसे आपको कोई पीसी आपका कोई एप्लीकेशन को एक्सेस कर रही है, ठीक है, तो आपको उसका एक नेट फ्लो एक टूल होता है, टॉप टकर निकाल सकते हो नेट फ्लो के, आप उसके करंट ट्रैफिक निकाल सकते हो, उससे आप चेक कर सकते हो। लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट टू मच फीजिबल। आप फायरवॉल लगाते हो तो उसमें सारा डेटा निकल जाता है, तो फायरवॉल लगाओगे तो उसके अंदर निकल जाएगा, या फिर कोई आपका मॉनिटरिंग टूल यूज करते हैं, सोलर विंड टूल हुआ है, और भी बहुत सारे एडवांस टूल आते हैं, तो टूल के थ्रू आप निकाल सकते हो। लेकिन राउटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ, राउटिंग का काम क्या होता है कि यू जस्ट हैव टू, जैसे एक लोकेशन ये है आपका, एक जैसे आप इंडिया में हो, ठीक है, अब बीच में आईएसपी है, अब आप एक यूएस में बैठे हो, यहाँ पे एक राउटर लगाए हो, राउटर 2, अब इनकी कनेक्टिविटी करना, तो यहाँ से ये राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे बीजीपी आपने चला दिया, इसके थ्रू या स्टैटिक राउटिंग, यहाँ पे रिचेबिलिटी बना दिया। अब इसके पीछे बहुत सारे यूजर बैठे हुए हैं स्विच के पीछे,
तब ये अलग अलग कनेक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो इन सारे चीज का इंफॉर्मेशन राउटर के थ्रू होते हुए इस राउटर पे जाता है। तो आप यहाँ से नेट फ्लो के थ्रू इसको आप निकाल सकते हो, उसके क्या क्या आपका सोर्स डेस्टिनेशन कम्युनिकेट कर रहा है वो भी आपको रिपोर्ट दे देगा। बट अगर आप चाहते हो कि आप अगर चाहते हो कि मेरे को एडवांस चाहिए, आपको मतलब एडवांस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप पालो अल्टो फाइवर लगा लो, उसमें पूरी आपकी डिटेल निकल के आ जाएगी। आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं किसी तरह का मतलब टूल यूज कर लूं, सो वो भी निकल जाएगा आपका। अच्छा, तो आप इसके बारे में बताएंगे आप? किसके बारे में? या इसमें बहुत ज्यादा इशू आते हैं, जैसे मैंने राउट कर दिया किसी सबनेट के थ्रू, किसी सबनेट पे या पब्लिक या तो खान जी देखिए इसमें आपको क्या है समझ में, आपको यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग में बताऊंगा आपको कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे काम करता है। इसमें आपको डायनेमिक राउटिंग के अंदर आपको मैं ओएसपीएफ बताऊंगा कैसे काम करता है, आपको बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर होती है ये बताऊंगा आपको, राइट। सो आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन करने के बता दूंगा। लेकिन अगर आपको स्टैटिक राउटिंग नहीं आती है, ओएसपीएफ क्या होता है, बीजीपी क्या होता है, कैसे प्रोटोकॉल काम करते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो आई वुड रिकमेंड कि आप सीसीएनपी एनआरसी का मेरा बैच चल रहा है, ठीक है, आप उसमें इनरोल कर दीजिए इनको एनआरसी का। इसमें पूरी डिटेल राउटिंग हम बात करते हैं, एक एक पैकेट फ्लो हम समझाते हैं कैसे कैसे काम चलता है। आई एम द ओनली इंस्ट्रक्टर कि मैं आपको जो सारी चीज कवर करूंगा, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। तो इसमें पूरी आपकी, जिसमें आपके 4 प्रोटोकॉल्स की मैं गारंटी देता हूँ, नॉट ओनली 4 प्रोटोकॉल्स, आपके EIGRP, राइट, आपका वो SPF, आपका मान के चलिए स्टैटिक राउटिंग भी उसमें कवर हो जाएगा, आपका BGP, आपका MPLS, आपका DMVPNs, आपका IPv6, राइट, और जो भी इसके अलावा और भी हमारा टॉपिक है ये सारे कवर हो जाएंगे। तो इतना अगर आप सीख लेते हो ना, तो यू विल बी द चैंपियन ऑफ द राउटिंग। जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल गायब हो जाएंगे और यू नेवर फेस एनी चैलेंज इन द राउटिंग्स, क्योंकि आपको अच्छे से डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज CCNP NRC, ठीक है, इसमें पूरे डिटेल में बात होती है। तो पालो अल्टो में हम सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे कैसे, कि पालो अल्टो में ऑलरेडी कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, आपको अलग डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, राउटिंग की थोड़ी लिवरेज लेना है, बट यू हैव टू वर्क इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। सर ये फायरवॉल में अपन डिफॉल्ट राउटर भी यूज करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, डिफॉल्ट राउटिंग में यूज करूंगा, स्टैटिक राउटिंग में यूज करूंगा, BGP कॉन्फ़िगर करूंगा, OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा, सब करके दिखाऊंगा आपको। सर मेरे एक क्वेश्चन था सर, साइड टू साइड VPN में एक साइड में अगर राउटर है और दोनों साइड में राउटर से दोनों मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में साइड टू साइड VPN बनाए यूजिंग राउटर, अगर ये ब्रांच ऑफिस में हमें अगर प्रोटेक्ट करना है मतलब फायरवॉल से, तो हम राउटर निकाल के वो फायरवॉल डालेंगे, वो तो फायरवॉल राउटिंग का भी काम करता है और सिक्योरिटी। हाँ देखिए, ये साइड साइड VPN के लैब है, देख रहे हैं आप, दो साइड्स हैं, साइड A साइड B। तो अगर राउटर यहाँ पे लगा होता, आप चाहो तो राउटर को रिप्लेस करके फायरवॉल लगा दो, जैसे मैंने लगा रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेम लैब है। तो सर फ्यूचर में वो राउटर की डिमांड कम होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर फायरवॉल जो, इसीलिए तो पालो अल्टो सब यूज करता है। पालो अल्टो जो फायरवॉल है, ये क्या क्या कर सकता है, साथ में सारे सिक्योरिटी स्टैक तो देता ही है, सिक्योरिटी फीचर जो है, इट यू आर गोइंग टू गेट एवरी सिक्योरिटी फीचर्स अलोंग विद राउटिंग आपको मिलता है। और बहुत पावरफुल राउटिंग, क्या क्या चला सकते हो, स्टैटिक राउटिंग, राइट, आप OSPF चला सकते हो, आप RIP चला सकते हो, आप इसमें BGP चला सकते हो। मैं रुको दिखाता हूँ, फाइल बंद नहीं किया मैंने ना, चालू है ना, बंद कर दिया क्या मैंने, अच्छा लैब बंद कर दिया मैंने। आप BGP चला सकते हो आप, राइट, आप इसमें OSPF V3 मतलब IPv6 के साथ भी चला सकते हो आप इसमें मल्टीकास्ट चला सकते हो। तो मतलब इतना कुछ कर सकते हो, तो क्यों राउटर खरीदने की जरूरत है, आप फाइल खरीदो ना यार, सब कुछ काम हो जाएगा आपका। तो फिर डेटा सेंटर में सर नेक्सस के ये बड़े बड़े जो राउटर्स होते हैं कुछ होते हैं सर, फिर फायरवॉल ही लगा के नहीं तो ठीक है, हर चीज का एक लिमिटेशंस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे अब डिपेंड करता है, अब डेटा सेंटर का आपने नाम लिया, एक होता है छोटा कस्टमर, अब एक डेटा सेंटर है, ठीक है। अब डेटा सेंटर के अंदर तो बहुत सारे एप्लीकेशन होस्टेड होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, राइट, डेटा सेंटर के अंदर। तो डेटा सेंटर को बहुत राउट को प्रोसेस करना, उसको लाखों मिलियंस राउट्स को प्रोसेस करना है, राइट। तो मिलियंस राउट्स को प्रोसेस करने के लिए अगर मैं फायरवॉल का काम भी कराऊं, मतलब सिक्योरिटी चेक्स भी कराऊं, और बोलूं कि तुम सिक्योरिटी चेक्स भी कराऊं उससे, और मैं बोलूं कि तुम साथ में 1 मिलियन राउट्स भी प्रोसेस करो, तो बेचारा मर जाएगा, समझे ना। इसीलिए डेटा सेंटर्स में आपको डेडिकेटेड राउटर्स लगे रहते हैं, उनका काम होता है सिर्फ प्रोसेसर का एक ही काम होता है कि आप भैया राउटिंग ही चेक करो, नो नीड टू डू एनी अदर वर्क। तो इसलिए राउटर यूज होते हैं कि जहां पे आपको
मिलियंस राउट है। आजकल इंटरनेट पे 8 मिलियंस राउट्स हैं, राइट? आपका 10 मिलियन करीब में राउट्स हैं। तो नॉट 10 मिलियंस, सॉरी 1 मिलियन करीब में राउट्स हैं, राइट? सो 1 मिलियन करीब में राउट मतलब 10 लाख करीब में राउट्स हैं इंटरनेट के। तो अगर आपको एक उतने राउट फायरवॉल पर डाल दो तो फायरवॉल डेड हो जाएगा वो। तो इसलिए आपको या तो बहुत हाई एंड का फायरवॉल लेना पड़ेगा या फिर डेडिकेटेड राउटर यूज करना और तो पड़ेगा। सर बात ये है कि राउटर तो जो है तो एक तरीके से बोला जाए तो राउटर तो बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है, लेकिन फायरवॉल जो होता है काफी महंगा डिवाइस होता है, तो सभी नेटवर्क को इकट्ठा करके एक जगह पे एंड किया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि बार हाँ, बार मतलब हर एक जैसे जगह पे आप तो फायरवॉल जैसे लगा नहीं सकते आप अपन। फायरवॉल खरीदने जाओगे तो बट नेचुरल राउटर फायरवॉल की जो कॉस्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो आपको कॉस्ट फैक्टर तो मैटर करता ही करता है। हर यस सर। डिवाइस का अलग अलग, जैसे फायरवॉल्स है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है बट नेचुरल राउटर स्विच से। तो जब भी आप खरीदने जाओगे तो इसका पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो आप क्यों नहीं सस्ते फायरवॉल खरीद लो? राउटिंग कराना है तो वही फायरवॉल यूज करो जो आपको फायरवॉल का काम कराना है। तभी इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके सर, एक क्वेश्चन लास्ट लास्ट हम्म। सर, अगर ये पालो अल्टो फायरवॉल एमपीएलएस को सपोर्ट नहीं ना करता, तो वो अगर इसमें लगाया ब्रांच ऑफिस में, तो वो एमपीएलएस के पैकेट कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मतलब अगर सपोर्ट नहीं करता तो आपका जो एमपीएलएस का पैकेट होता है ना, देखो एमपीएलएस का पैकेट जो होता है आपका, जैसे आईएसपी का नेटवर्क है, ठीक है? तो आईएसपी का जो राउटर होता है ना, तो मान के चलो ये एमपीएलएस नेटवर्क है पूरा, और मान के चलो कि ये आपका ब्रांच ऑफिस है, और मान के चलो कि ये आपका फायरवॉल यहाँ पे है। यहाँ पे आपने यहाँ पे बीजीपी चला दिया, तो यहाँ पे हाँ बीजीपी तो सपोर्ट करेगा, राइट? हाँ लेकिन बीजी आपका एलडीबी पैकेट सिर्फ यहाँ तक ही सपोर्ट करता है। एमपीएलएस का एलडीबी पैकेट होता है वो सिर्फ आपका, ये पी होता है, बीच का पी राउटर होता है, ये पी राउटर होता है, इन्हीं के बीच चलता है, राइट? एलडीपी। तो जब यहाँ से स्विच होगा तो सिंपल बीजीपी पैकेट बन जाता है ना, ये तो बीजीपी सपोर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बॉर्डर का जो राउटर रहेगा सर, उससे अपन फायरवॉल तक जब लाएंगे तो उसको ईबीजीबी में डाल देंगे, है ना? हाँ, एमपीएलएस में बस चलता ही नहीं है, बस सिंपल यही राउटर में होता है। और 2 एस नंबर का आपस में कनेक्ट हो हाँ, जाएगा। बस खत्म खत्म। टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आप लोग को, ठीक है? आप लोग सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइए। नौकरी.com में ये आता है जैसे साइबर सिक्योरिटी की ओपनिंग आती है, पालो अल्टो नेटवर्क सिक्योरिटी की आती है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है क्या एक दूसरे से, मतलब? तो जहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड आप यूज कर रहे हो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो भी आपको नेटवर्क सिक्योरिटी आना ही चाहिए, नेटवर्किंग आना ही चाहिए। ओके नहीं आएगा तो आप वहां पे भी स्ट्रगल करो, वहां भी आपको यही सिखाया जाता है। ओके आपको उसमें क्या क्या आता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ ऑडिट के मॉड्यूल होते हैं, कुछ नेटवर्किंग के मॉड्यूल होते हैं, कुछ फायरवॉल के। जब तक आप नहीं सीखोगे तो कैसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी को समझोगे? आप उसमें आपका फिजिकल सिक्योरिटी भी आ जाता है, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको। ओके मतलब वो मुझे पूछना था, साइबर सिक्योरिटी में मतलब वो फायरवॉल भी रहते हैं क्या, जैसे एएसए चेक पॉइंट हाँ, FortiGate? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और आप ऑडिटर बनते हो या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हो तो आपको सबका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप काम कैसे करोगे? आपको डिपेंड करता है ना कहाँ पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाए, किस सेक्शन में आप हो। आपके हिसाब से तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा डोमेन है। ओके ओके मतलब अगर नौकरी.com से वो साइबर सिक्योरिटी के लिए ओपनिंग आता है और हमें फायरवॉल पालो अल्टो का नॉलेज रहता है, तो हम अप्लाई अप्लाई करो, कर सकते हैं? आप अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, आप उनको बताओ कि मैंने पालो अल्टो फायरवॉल आती है। तो आप देखो, आप साइबर सिक्योरिटी के नेटवर्क के आपके अंदर ही आपके पास कई रोल्स हैं। एक होता है कि आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो आपको हो सकता है कि लेवल 4 पे ना लें, लेकिन और भी रोल्स होंगे जो इनिशियल छोटे छोटे काम करने के लिए, उसमें आपको ले लेंगे। फिर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, आप अपने आप से। मुझे एक्चुअली ये कंफ्यूजन था, जैसे वो साइबर क्राइम रहता है तो वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रहता है, ऐसा मुझे मुझे मैं मानता था, लेकिन अभी पता चला दोनों में भी रहता है फायरवॉल, साइबर हाँ, फायरवॉल आपको, सिक्योरिटी। फायरवॉल नेटवर्क आपको जितना भी सिक्योरिटी है सब जगह आपको मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। ओके यस सर यस। ओके, सो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक यू गाइज आर रियली आस्क्ड वेरी नाइस क्वेश्चन टुडे, ठीक है? मुझे भी बहुत मजा आया, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते रहो, बिल्कुल बिना टेंशन का, ठीक है? किसी तरह का मन में क्वेश्चन आया पूछ डालो, ठीक है? क्वेश्चन से कोई कंप्रोमाइज मत करो। नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत R&D करूंगा आप लोग के लिए, फिर बताऊंगा अगले दिन। बट पूछो जरूर आप लोग, बिल्कुल हेजिटेट मत करो, मेक लाइफ वेरी इजी, ठीक है? हाँ, बताइए सर। सर बस एक वर्ड में बता दीजिएगा, जो राउटर्स में अपन डिफॉल्ट राउटिंग जो चलाते हैं वो लास्ट एंड क्लाइंट एंड या फिर लास्ट एंड राउटर पे चलता है ना, वो केवल एक्सेस वाले पे? सिर्फ आपका जो जहां से आप इंटरनेट में बाहर जाते हैं वहीं पे डिफॉल्ट राउट आप मैक्सिमम जगह यूज करते हैं। आप लैन में भी कर सकते हैं, लास्ट जहां से आप बाहर जाते हैं। हाँ जी सर, वहां पे ठीक है सर।
ठीक है, सी यू ऑन मंडे गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, मंडे को कनेक्ट करते हैं। थैंक यू ठीक है, सर, थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। इन्वेंटरी all right guys, so good evening you all, right? Hope I'm audible. Let's start the session, right? Let गुड me इवनिंग share my सर। screen. Good evening, good evening, hope आप सब अच्छे होंगे आज। आप कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास का। आप लोग का बस आज दुआ है, सब ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वीक वी हैव डन डिस्कशन अबाउट क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था अबाउट द SP3 आर्किटेक्चर, राइट? सो फायरवॉल का आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, एंड वी हैव डन वेरी गुड डिस्कशन अबाउट व्हाट इज द SP3 आर्किटेक्चर, राइट? और इसका मतलब क्या होता है, और एक्चुअल इसका जो यूसेस होता है, मतलब किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं एज ए लेमैन एग्जांपल। सो सारी चीजें आई एक्सप्लेन वेरी वेल। आई होप कि आप लोग को सब डाइजेस्ट हो गया होगा, एंड यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड SP3 आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पालो अल्टो फायरवॉल जो है, वाई इट्स पॉपुलर टू मच। तो उसके पीछे रीजन यही है कि उसके पीछे एक ऐसा हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है जो बाकी सब फायरवॉल से इट्स मेक द पालो अल्टो फायरवॉल इज अ यूनिक फायरवॉल। ठीक है, सो इस वजह से आपका SP3 आर्किटेक्चर वाज लाइक वेरी मच पॉपुलर, एंड अभी भी ये बहुत पॉपुलर है। एंड मतलब पालो अल्टो का वन ऑफ द यूनिक फीचर आई कैन से दैट इज SP3 आर्किटेक्चर। सो अगेन आई एम सेइंग, राइट, कि अगर आप कहीं जाते हो डिस्कशन के लिए, एनी टेक्निकल डिस्कशन, एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड व्हाट इज द SP3 आर्किटेक्चर। उसी के साथ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन जो है, राइट, दैट इज गोइंग टू आस्क द पैकेट फ्लो ऑफ द पालो अल्टो फायरवॉल। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैकेट फ्लो है, राइट, कि ट्रस्ट में थ्योरी तो है ही है ये। जो थ्योरी में आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली सेम चीज। थ्योरी का मतलब क्या है? जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, दिस इज थियोटिकल स्लाइड, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई स्टार्ट द सेशन, मतलब जब भी मैं स्टार्ट सेशन करता हूँ एक या दो क्लास, तो सेशन यहीं से स्टार्ट होता है पैकेट फ्लो से, एंड जब सेशन एंड होता है तो यहीं पे एंड होता है। एंड दिस इज लाइक एवरी बेस्ट सिनारियो, कि ऐसा कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, हर बार का ऐसे ही होता है, क्योंकि यही प्रोसेस है एक कंप्लीट समराइजेशन करने के लिए, कि आपने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा और क्या आपने सीखा थ्रू आउट द जो भी हमारा पीरियड है जिसमें हम पूरा अपनी लर्निंग कर रहे हैं, उसमें क्या आपने क्या सीखा। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मैं डे 1 पे व्हेन आई एक्सप्लेन दिस ऑल पैकेट फ्लो, सो प्रोबेबली कुछ लोगों को 20% डाइजेस्ट होगा, कुछ लोगों को 30% डाइजेस्ट होगा, कुछ लोगों को 40% होगा, किसी को 60% होगा, किसी को उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट? कि अगर आपको अच्छा बैकग्राउंड है सिक्योरिटी का, अगर आपने पहले कभी रिकैप कर रखा, तो यू विल गेट मोर नॉलेज, राइट? 80 90 100% भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है इनिशियली व्हेन आई गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द पैकेट फ्लो, सो यू डोंट हैव टू वरी, राइट? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ना बहुत सारे सेक्शंस हैं। आप देखो, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक्स का अपना कुछ मतलब है, अपना कुछ सिग्निफिकेंस है, राइट? सो एक एक ब्लॉक की जो 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 भी डिमार्केशन है हर एक ब्लॉक का, वो हर एक ब्लॉक का मैं एक एक छोटे छोटे चंक्स में, जब मैं आगे के सेशंस लूंगा, कौन सा सेशन? जैसे आगे का सेशन मतलब कि जब आप कंटेंट पढ़ोगे, एप्लीकेशन आईडी पढ़ोगे, आप डिक्रिप्शन पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें इस ब्लॉक में है। आपको ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से, सारी चीजें को, कंटेंट इंस्पेक्शन है, इसमें आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पे SSL डिक्रिप्शन है, तो सारी चीजें आपका जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो PPT में है, बट ये स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं। बट अभी क्या है कि अभी एक समरी ऑफ द कंप्लीट टॉपिक, जो भी हमारा एक समराइजेशन है पैकेट फ्लो का, वो यहाँ पे है। सो इफ यू नॉट एबल टू डाइजेस्ट 100%, ठीक है, तो आप डिप्रेशन में मत जाना है, सोचने मतलब यार कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे कलीग्स को समझ में आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स पैकेट फ्लो,
बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू एवरीवन। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, राइट्स, एंड ट्राई टू मेक अ नोट्स कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। एक एक ब्लॉक को मैं बहुत ही स्मॉल स्मॉल चंक्स में ब्रेक करके ही बताऊंगा, और आप लोग को होपफुली बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एंड सेम चीज जो यहाँ ब्लॉक में आपको दिख रहा है ना सारे, ये मैं आपको डीबग में फायरवॉल्स पे, सीएलआई पे, सारा कुछ जब हम ट्रबल शूटिंग का सेशन, लाइव ट्रबल शूटिंग करेंगे, जिसमें मैं टिकट्स बनाऊंगा आप लोग के लिए, राइट, व्हेन द सेशन इज गोइंग टू फिनिश। तो हम कंप्लीट 2 आवर्स का एक सेशन करते हैं जिसमें हम कंप्लीट लाइव सब कुछ आपको मैं डीबग, जिसमें आपको पैकेट कैप्चर्स, हाउ वी कैन टेक ए पैकेट कैप्चर, हाउ वी कैन टेक द डीबग्स, रियल डीबग्स की, मतलब आपको सीएलआई पे फ्लो बेसिक्स आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना, जो डीबग का एक प्रोसेस है, जो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडवांस सिनारियो में ट्रबल शूटिंग की जब हम बात करते हैं, तो हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ सिनारियो। अगर आपको पॉलिसी नहीं चेक करना है, आपको नेट रूल नहीं चेक करना है, आपको राउटिंग नहीं चेक करना है, आपको सिर्फ डीबग पढ़ के ये पता करना है कि वेयर इज द इशू। सो दोज काइंड ऑफ द स्टफ यू आर गोइंग टू गेट, एंड जब वो चीज मैं बताऊंगा आपको ना, तो ये पैकेट फ्लो में जो लिखा हुआ है ना, स्लो पाथ, फास्ट पाथ, एप्लीकेशन आईडी, ये इनग्रेस इंटरफेस, और ये जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, इग्रेस लिखा हुआ है, ये सब कुछ उसमें दिखेगा। ट्रस्ट में, ये सब कुछ उसमें दिखेगा जब पैकेट फ्लो आप लेगो। तो ये कोई फर्जी नहीं है, ये कुछ आपका मतलब कि इसमें किसी तरह का, मतलब कहने का मतलब कि ये एक कोई सिर्फ थियोरेटिकली समझाने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जो भी आपके फायरवॉल में प्रोसेसिंग है, जिस तरीके से डीबग काम करता है, एवरीथिंग इज कंपाइल है, एंड उसी को अभी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइक पैकेट फ्लो ऑफ द Palo Alto फायरवॉल, राइट, फ्लो लॉजिक, ठीक है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। किसी के पास कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, राइट। मेरा ये हमेशा रहता है कि जब भी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, और लास्ट में भी हम क्वेश्चन ले लेंगे, और बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन से, या किसी तरह का कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, सो प्रोबब्ली आई विल हेल्प यू टू आंसर दोज क्वेरी, राइट। सो यू गाइस टर्न, आप लोग बताओ मुझे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये पैकेट फ्लो पे ही पूरा सिलेबस है क्या? जैसे मैं देख रहा था पैकेट फ्लो का, तो पूरा उसी पे ही है क्या सर? पूरा मतलब कि क्या मतलब पूरा? जी देखो एक्चुअली क्या है ना, कि जब भी आप राउटिंग स्विचिंग आप पढ़ते हो, या कोई भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, तो आपको एक फ्लो होता है, हर एक चीज का पैकेट फ्लो होता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, राइट। तो वही सेम एक चीज समरी है कि ये जो पैकेट फ्लो है ना, इट्स लाइक आप ये समझ सकते हो कि पूरा समरी ऑफ द फायरवॉल, कि आपकी फायरवॉल किस तरीके से काम करती है। तो अगर आपको पैकेट फ्लो ही नहीं समझ में आएगा, सो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक एवरी पार्ट्स ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफ द फायरवॉल्स। सो इसमें ये बताया जाता है कि एक फायरवॉल के अंदर जब पैकेट एंटर करता है, राइट, तो उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, राइट, मतलब किस तरीके से उस फायरवॉल की प्रोसेसिंग रहती है, किस तरीके से फायरवॉल काम करता है। मतलब ये फायरवॉल है मेरा, राइट, इस फायरवॉल में मेरा एक पैकेट आया किसी इंटरफेस से, जब ये पैकेट हिट किया फायरवॉल के इंटरफेस पे, तो फायरवॉल क्या करती है उस पैकेट को, और जब तक ये पैकेट फायरवॉल के अंदर राउंड 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 घूमते रहता है, और जब इन हुआ पैकेट को और जब आउट हुआ, इसके बीच में क्या होता है और कैसे पैकेट आउट जाता है, तो ये कंप्लीट एक साइकिल होता है, तो इसी को पैकेट फ्लो बोलते हैं। तो इसकी बहुत डिपेंडेंसी होती है, और ये आपकी क्लैरिटी है, मतलब आपको ऑलमोस्ट Palo Alto फायरवॉल आता है। ट्रस्ट में इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, जब तक आप इसको सारे सेक्शन को आप कवर नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगा, राइट। बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ द Palo Alto फायरवॉल, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब मुजम्मिल पूछ रहे हैं मेरे से चैट पे, राइट, कि सर व्हाट इज द डीबग, राइट। सो डीबग एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से आपको पैकेट को समझने का, जैसे आप कोई पैकेट होता है किस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो डीबग में उन पैकेट्स को कैप्चर आप लेते हो। जैसे आप एक तरह से वॉइस आप पे पैकेट कैप्चर लेते हो ना, उसको आप स्निप करके पैकेट कैप्चर लेके उसको आप रीड आउट करते हो कि हाउ द थिंग्स इज वर्किंग, राइट। सिमिलर वे में डीबग्स इज गोइंग टू गिव अ डिटेल्ड आपका पैकेट कैप्चर, उसमें एक एक चीज, एक एक पैरामीटर्स, आईपी, प्रोटोकॉल, पोर्ट्स, किस पॉलिसी को हिट किया, किस जोन को हिट किया, किस इंटरफेस आया, किस इंटरफेस से बाहर गया, इनग्रेस इग्रेस इंटरफेस। सो ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब लेयर 2 से लेकर आपका लेयर 7 तक की राउटिंग से लेकर सब कुछ उसमें अवेलेबल रहता है। डीबग जस्ट कंप्लीट आपके जितने पैकेट्स होते हैं उसको ब्रेक कर देता है कंप्लीट, उस ब्रेक करके उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करता है, जिससे आप उसको पढ़कर समझकर आप उसको एनालाइज कर लेंगे। ट्रस्ट में, जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा कि ये जब
इस डायग्राम को मैं कंपेयर कराऊंगा और पैकेट फ्लो का डिबग लेकर मैं जब दिखाऊंगा आप लोगों को, जब आप लोगों का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, तो जब ट्रबल शूटिंग की हम बात करेंगे तो यू गाइज लव इट। ओके, सो क्योंकि उसमें इस तरीके से दिखाया जाता है डिबग जब लेते हो तो अब बहुत समझ में अच्छे से आ जाता है। उसमें ये भी बताया जाता है कौन से पॉलिसी को हिट किया, कौन सा राउट को हिट किया, कौन से इंटरफेस को हिट किया, जो जनरली नॉर्मल आप वायसा कैप्चर लोगे तो उसमें वो सारी चीजें नहीं आती हैं। ठीक है मुझे मिल, तो debug is just getting the detailed information about the packets in short. ठीक है सर, ओके। All right, so let's start. Okay, so now I am talking about the packet flow. So सबसे पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी को समझो कि मान के चलो कि आपके पास एक फायरवॉल है, राइट? ये आपके पास एक फायरवॉल, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपकी एक फायरवॉल है, राइट? मैं यहाँ लिख देता हूँ फायरवॉल। सो शॉर्ट फॉर्म फायरवॉल हुआ। अब फायरवॉल में देखो क्या होता है कि बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, जैसे एक इंटरफेस ये हो गया और एक इंटरफेस ये हो गया, और भी इंटरफेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं 4 इंटरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक इंटरफेस तो जैसे आप लोग जस्ट एग्जांपल MGMT इंटरफेस होता है, मैनेजमेंट, जिसके बारे में आप लोग जानते हो क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको GUI एक्सेस लेना है तो आपको ये इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। GUI एक्सेस लेना है या रिमोट एक्सेस लेना है तो यू कैन टेक वाया द मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसी तरीके से फायरवॉल पे आपके कुछ फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं सिमिलर टू द मैनेजमेंट इंटरफेस। वो आपके ईथरनेट इंटरफेस हो सकते हैं, फाइबर इंटरफेस हो सकते हैं, और आपके अलग टाइप के भी और इंटरफेस हो सकते हैं। तो मान के चलो कि आपका ईथरनेट इंटरफेस है तो आप उसका सिंपल डेफिनेशन ईथरनेट 0/0 इस तरीके से लिखा होगा, और माइट भी ये आपका लिखा होगा ईथरनेट 0/1 लिखा होगा, जैसे आप राउटर पे इंटरफेसेस होते हैं, और ये आपका प्रोबेबली ईथरनेट 0/2 लिखा होगा। ठीक है, अब ये फायरवॉल है, और मान के चलो कि ये जो आपका प्रोबेबली ये वाला जो पोर्शन है ये कनेक्टेड है आपका ISP से, मतलब ISP से करने का मतलब ये WAN कनेक्शन है, राइट? मतलब आप यहाँ से इंटरनेट पे जा रहे हो, राइट? तो ये इंटरनेट पे आप जा रहे हो, और यहाँ पे जो आपका ये पीछे का जो पोर्शन है यहाँ पे जो कनेक्टेड है, ये हो सकता है कि आपका एक LAN हो, ये वाला भी, और ये भी आपका LAN है, राइट? जहाँ पे आप मतलब ऑफिस में कनेक्टेड हो, तो LAN हो गया ये भी, और ये भी आपका LAN हो गया। अब इनके कुछ जोन्स होते हैं, कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करो, आप बिल्कुल प्लेन आप पैकेट समझो पहले। तो अब यहाँ पे मान के चलो कि मैं बैठा हूँ, मैं PC लेकर यहाँ बैठा हूँ, ठीक है? अब यूजर क्या करेगा? जनरली आप PC लेकर बैठते हो तो व्हाट बेसिकली यू डू, आपको बेसिकली ऑफिस में बैठे हो या किसी भी डेटा सेंटर में बैठे हो, सो बेसिकली यू नीड टू हैव अ इंटरनेट एक्सेस। आप एक जनरल कि आपको बेसिकली सबसे पहले चीज आप जाकर google.com खोलते हो कि मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही जनरल प्रैक्टिस होती है। google.com खोलते हैं, और अगर मान के चलो कि अगर आप google.com नहीं खोलते तो अपनी ऑफिस के एप्लीकेशंस खोलते हो। एप्लीकेशन का मतलब कोई भी आप, जैसे अगर आपको अपने ऑफिस की टाइम शीट फिल करनी है, या आपकी ऑफिस की कोई सैप की एप्लीकेशन खोलनी है, या कोई इस तरह का कोई आपके मतलब जो इंटरनल एप्लीकेशंस हैं उसको खोलना है, कुछ लॉगिन करना है, तो वो सारे एप्लीकेशंस को आप खोलते हो। तो उसके लिए भी आपका जो जो होस्टेड होता है, जो एप्लीकेशन होस्टेड होती है, या तो आपका ओवर द वैन डेटा सेंटर्स में होती है, या आपका लोकली सर्वर होता है। तो लोकली सर्वर बेसिकली नहीं होता है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू होस्टेड ओवर द वैन इंटरनेट। जो भी आपका वैन सर्किट्स होते हैं, वैन प्रोसेसिंग होते हैं, वहां पे आपका डेटा सेंटर या क्लाउड प्रोवाइडर में ये सारी चीजें आपकी होस्टेड होती है। जस्ट टेक ए सिंपल एग्जांपल कि आप ऑफिस में बैठे हो और यू हैव टू एक्सेस द google.com। तो जब आप यहाँ पे बैठे हो PC से, google.com किया, तो आपका सबसे पहले क्या बनेगा? तो देखो, आपके लिए यहाँ पे फोकस करो ऊपर की तरफ, जब आप करोगे तो आपकी ये PC एक पैकेट बनाएगी। योर PC इज गोइंग टू मेक वन पैकेट। ध्यान से समझो आप लोग, तो ये आपका एक पैकेट है। इस पैकेट के अंदर क्या क्या होगा? इस पैकेट के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है? इस पैकेट के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, तो मैं कुछ कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और आप लोग इसको ध्यान से समझो, राइट? व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द पैकेट। तो यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ पे कुछ मैक एड्रेस होगा जिसको सोर्स मैक बोलते हैं, डेस्टिनेशन मैक बोलते हैं, राइट? सोर्स IP बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप डेस्टिनेशन IP बोल सकते हैं इसको, राइट? यहाँ पे आप सोर्स पोर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे आप डेस्टिनेशन पोर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, लेयर 7 बोल सकते हैं, और बीच में और भी कुछ कुछ होता है जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बट अभी मान के चलो लास्ट में आपका कंटेंट होता है, राइट? कंटेंट मींस डेटा, आप इसको पेलोड भी बोल सकते हो, राइट? कुछ भी आप बोलो, दैट इज गोइंग टू बी सेम।
सो मैं ये रिपीट बार बार इसलिए करता हूँ ना कि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाए बात, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि एक पैकेट दिखता कैसे है। तो इस पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गए, देखो यहाँ पे आपका लेयर 2 इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका लेयर 3 इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका लेयर 4 इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका लेयर 7 इन्फॉर्मेशन हो गया, और फाइनली आपका डेटा पेलोड हो गया, कंटेंट हो गया, राइट। सो जो आपकी अगर आप बात करते हो ओएसआई मॉडल की, टीसीपी आईपी मॉडल की बात करते हो, राइट, समझो बात को कैसी क्रोनोलॉजी बन रही है। तो आप क्या होता है ओएसआई मॉडल में जब बात करते हो, टोटल आपके पास कितनी लेयर्स होती हैं, टोटल आपके पास 7 लेयर्स होती हैं, राइट। लेकिन ये ओएसआई मॉडल आपका जो 7 लेयर का होता है, राइट, ये एक रेफरेंस होता है, इट्स अ ब्लूप्रिंट, इसको एक्चुअल हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, राइट। तो क्या क्या हमारे पास होता है, हमारे पास सबसे पहले होता है आपका फिजिकल लेयर होता है, राइट, आपके पास डेटा लिंक होता है, राइट, डेटा लिंक लेयर होता है, आपके पास नेटवर्क लेयर होता है, राइट, आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, राइट, आपके पास और क्या होता है, आपके पास सेशन होता है, सेशन लेयर होता है, और आपके पास प्रेजेंटेशन होता है, राइट। और फाइनली आपका जो ऊपर वाला है, आप इसको एक मिनट डिलीट करता हूँ, इसको आप मान के चलो, एक आपके पास एप्लीकेशन लेयर होता है। तो ये आपका ओएसआई मॉडल का लेयर हुआ, राइट, ओएसआई मॉडल हुआ है, राइट। ये एक्चुअली आपका एक रेफरेंस मॉडल होता है, राइट, इसको एक्चुअली हम यूज नहीं करते हैं, बट इसको रेफरेंस लेके एक हमारे पास एक्चुअल टीसीपी/आईपी मॉडल हमने बनाया, राइट, टीसीपी/आईपी मॉडल जो एक्चुअल मॉडल है जिसको हम यूज करके पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं या कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जस्ट आपके 4 लेयर्स ही होते हैं, आपके बहुत सारे लेयर नहीं होते हैं, 4 लेयर होते हैं। इन तीनों को मिलाकर आपका एक लेयर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हमेशा इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। जस्ट मैं आप लोग को रिकैप करा रहा हूँ, ये सब सीसीएनए का पार्ट है, सीसीएनपी का, सीसीएनए का ही बेसिकली, बट आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे काम चलता है, ठीक है। फिर इसको आप इंटरनेट या नेटवर्क लेयर कुछ भी बोल सकते हैं, और फिर फाइनली आपका फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर यू कैन कंबाइन, और मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, कई जगह 5 लेयर भी मिलती है आपकी, और कई जगह सिंगल लेयर मिलते थे। यहाँ पे आपका डेटा लिंक लेयर भी हो गया, और यहाँ पे आपका फिजिकल लेयर हो गया, ठीक है। सो बेसिकली देखो आप, तो यहाँ पे फिजिकल लेयर का हटा दो क्योंकि फिजिकल लेयर हमेशा केबल होता है। तो आपका डेटा लिंक लेयर का काम यहाँ पे है, देखो है, नेटवर्क लेयर का भी काम यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी काम यहाँ पे है, राइट, और आपका एप्लीकेशन लेयर का भी काम यहाँ पे है। तो मतलब जो आपकी टीसीपी आईपी है उसके हर एक पैरामीटर्स को यू आर गोइंग टू यूज। और फिजिकल लेयर पे क्या यूज कर रहे हो, ये केबल यूज कर रहे हो। तो इस जितनी भी 5 लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट ऑल आर गोइंग टू बी यूज विदाउट इफ एंड नो बट, राइट, कुछ भी हम यहाँ पे हाइड नहीं कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी यूज। तो डेटा लिंक आपको मैक को समझता है, नेटवर्क लेयर आपका आईपी को समझता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपको पोर्ट्स को समझता है, एंड एप्लीकेशन लेयर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड योर एक्चुअल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, राइट, तो फेसबुक इज योर एप्लीकेशन, राइट। आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप इज योर एप्लीकेशन, राइट। आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, यूट्यूब इज योर एप्लीकेशन। आप गूगल मीट यूज करते हो तो ये भी एक एप्लीकेशन है। आप टीम्स यूज करते हो तो ये भी आपका एप्लीकेशन। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन हैं। जितने पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट नंबर क्या होता है, 23 हो गया, 443 हो गया, ये सारे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट नंबर होते हैं। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, आईपी हो गया, जैसे 192.168.10. ये आपका आईपी हो गया। डेटा लिंक पे क्या होता है, मैक होता है, जैसे आपका किसी तरह से AA:BB:CC:DD, ये सारे मैक्स होते हैं। फिजिकल लेयर पे केबल होता है। तो जब एक पैकेट बनता है तो इस पैकेट के अंदर दैट इज गोइंग टू कैप्चर ईच एंड एवरी पैरामीटर्स जो आपको चाहिए, राइट। इट इज गोइंग टू कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग। सो जब भी पालो अल्टो फायरवॉल कम्युनिकेशन करती है, तो मैं इधर का थोड़ा सा कम्युनिकेशन हटा देता हूं ताकि आप लोग क्लियर देखें। So जब भी communication is going to happen between the firewalls, right? So what is going to be happen? Let me just mute. I believe. So the packet is going to be built. So ये packet आपका ये वाला हुआ. This is known as the packet. So this is the packet. One packet. So इस one packet के अंदर बहुत सारी information है. तो जैसे ही आपका PC से पैकेट निकला एंड आपके लैन क्या होगा, आपके स्विच को हिट किया। ये लैन पे बेसिकली स्विच ही होते हैं, तो आपको स्विच को हिट किया। स्विच को हिट करने के बाद दैट इज गोइंग टू हिट टुवर्ड द फायरवॉल्स, राइट। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। सो जिस इंटरफेस को ये हिट करता है फायरवॉल, राइट, द इंटरफेस व्हिच इज गोइंग टू बी हिट बाय दिस पैकेट, दैट इंटरफेस इज नोन एज इनग्रेस इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इनग्रेस इंटरफेस, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनग्रेस मीन्स कि जहां पे पैकेट आपका इन हुआ फ्रॉम द पीसी टू द फायरवॉल, राइट।
सो इसी को हम बोलते हैं इनपुट पैकेट्स बोलते हैं, या इनपुट इंटरफेस बोल सकते हैं, इन पैकेट बोल सकते हैं आप, या इसको आप रिसीव बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, द मीनिंग इज गोइंग टू हैपन सेम, राइट। सो आपका जो भी पैकेट या तो रिसीव हुआ, या तो इनपुट हुआ, या तो इनग्रेस हुआ, दैट इज द सेम मीनिंग। सो देखो, सबसे पहला आपका इस पैकेट फ्लो में जब देखोगे, लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको एसआईएन टीसीपी आता है मुझे पता है, तो मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे तो देखो, सबसे पहला जो ब्लॉक है ये हमारा इनग्रेस है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इनग्रेस का मतलब कि आपका पैकेट रिसीव एट द फायरवॉल इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड हो, और यहाँ पे जैसे ही ये अपना एक पैकेट को यहाँ पे रिसीव कराया, तो ये भी एक तरह से इनग्रेस इंटरफेस हुआ, ठीक है। तो द मोमेंट द पैकेट इज गोइंग टू लैंड टू मी, दैट इज नोन एज द इनग्रेस इंटरफेस, रिसीव पैकेट इंटरफेस, इनपुट पैकेट इंटरफेस, इन इंटरफेस वेयर आई एम रिसीविंग द पैकेट। अब क्या हुआ, जब पैकेट रिसीव्ड ऑन द फायरवॉल इज गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, द फायरवॉल इज गोइंग टू डू। सो आफ्टर सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब ये फायरवॉल कुछ प्रोसेसिंग किया, राउंड 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 राउंड, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, बट राउंड का मतलब ये समझो बीच वाला जो ब्लॉक देख रहे हो। अब फाइनली इस पैकेट को बाहर भेजना है, मतलब आपको आउट जाना है पैकेट को लेकर। तो जब ये प्रोसेसिंग आउट होगा, तब ये सबसे नीचे आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं इग्रेस इंटरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग? इग्रेस इंटरफेस। सो इसको आप बोलोगे इग्रेस इंटरफेस, मतलब जिस इंटरफेस से पैकेट आपका बाहर जाएगा वो इग्रेस इंटरफेस, आपको इसको आउट इंटरफेस बोल सकते हैं, राइट। एंड यू कैन से आउटपुट पैकेट भी इसको बोल सकते हैं, और इसको आप सिंपल ट्रांसमिट पैकेट भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो द मीनिंग इज गोइंग टू बी सेम। आप इनग्रेस बोलो, इग्रेस बोलो, इन बोलो, आउट बोलो, रिसीव बोलो, ट्रांसमिट बोलो, दैट इज ऑल इज गोइंग टू बी सेम। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी कहानी ये है कि मान के चलिए कि आई हैव वन पैकेट, ये वाला पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। जब ये पैकेट फायरवॉल के इस इंटरफेस पे लैंड किया, तो फायरवॉल क्या करेगी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फायरवॉल इज गोइंग टू डू? फायरवॉल जैसे ही इस पीसी से पैकेट रिसीव किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इट इज गोइंग टू डू? द फर्स्ट स्टेप फायरवॉल इज गोइंग टू डू, जो भी इसके अंदर लेयर 2 इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 इंफॉर्मेशन है एंड लेयर 4 इंफॉर्मेशन है, इन सबको एक्सट्रैक्ट करेगी, राइट। यू कैन सी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी लेयर 2, मतलब लेयर 2 का मतलब मैक एड्रेस, लेयर 3 का मतलब आईपी एड्रेस, लेयर 4 का मतलब कि आपका जो भी पोर्ट्स नंबर है, दैट ऑल इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड अलोंग विथ आपका किस इनग्रेस इंटरफेस पे आया, मतलब इंटरफेस का आईडी, कौन सा इंटरफेस रिसीव हुआ। तो यहाँ पे इथरनेट 0x0 है, आप लोग देखो यहाँ पे इथरनेट 0x0, तो उस इंटरफेस का वो आईडी भी रखेगा अपने पास। साथ में एक जोन भी इसके लिए चाहिए होता है, जो आप लोग अभी नहीं पता जोन क्या होता है, बट अभी जस्ट मान के चलो कि हर एक इंटरफेस के साथ एक जोन डालना पड़ता है हमें, हर एक इंटरफेस के साथ जोन डालना पड़ता है, कुछ एचए इंटरफेस को छोड़कर। सिर्फ एक ऐसा एचए इंटरफेस है जो आपको नहीं पता है, बट अभी मान के चलो, आगे मैं सारा इसको डिटेल में बताऊंगा जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो कि आपको हर एक जोन के लिए, हर एक इंटरफेस पे एक जोन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जोन का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन लेटर, ओके। सो अभी उसको हम मैच नहीं करते हैं, नहीं तो फिर हम डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जैसे ही पैकेट रिसीव हुआ, द पैकेट इज गोइंग टू ट्रीटेड इन दिस वे कि द फायरवॉल इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4 इंफॉर्मेशन। वंस द इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, वो उसको अपने पास रखेगी। और दूसरा क्या करेगी कि इसके साथ एक चीज और चेक करेगी कि क्या जो मैंने पैकेट रिसीव किया ये वाला, इसमें कोई आईपी फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली रिक्वायर्ड है क्या। अब इसका क्या मतलब होता है, आईपी फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है कि जैसे कोई पैकेट आता है, ठीक है, अब हर एक पैकेट का कुछ अपना साइज होता है। अब ये पैकेट आपका फायरवॉल के एक इंटरफेस पे लैंड किया, जैसे मान के चलो फायरवॉल है, यहाँ पे ये पैकेट आया, इस पे लैंड किया, ठीक है। अब जो फायरवॉल होते हैं ना, हर एक इंटरफेस की कुछ अपनी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है, जिसको हम बोलते हैं एमटीयू। तो बाय डिफॉल्ट ये साइज 1500 बाइट्स का होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो मान के चलो कि ये पैकेट अगर 1500 बाइट्स का है, ये मान के चलो 1500 बाइट्स का पैकेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फायरवॉल इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब बोलेगा ठीक है तुम मेरे रेंज में। ऐसे समझो कि अगर मान लो कि ये पाइप है आपका, और ये बोलता है कि मैं पर मिनट या पर सेकेंड मैं
1 लीटर पानी को प्रोसेस कर सकता हूँ, 1 लीटर वाटर को प्रोसेस कर सकता हूँ। इसकी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन आपने इसमें अगर 1.5 लीटर वाटर डाल दिया तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी मैनेजेबल। सो अब क्या करोगे आप, आपका बफर में जाएगा या फिर आप कहीं और स्टोर करोगे या फिर आपको पाइप की साइज बढ़ानी पड़ेगी, बट आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि आप पाइप की साइज बढ़ा सको, तो फिर क्या करोगे, आप बफर में पानी को स्टोर करोगे और फिर आप धीरे धीरे करके उसको भेजोगे। सेम केस इज गोइंग टू बी हैपन कि फायरवॉल बोलती है कि मैं मैक्सिमम कोई भी पैकेट्स मेरे पास आ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट मोर देन द 1500 बाइट पैकेट साइज। अगर इससे ज्यादा आता है तो यू जस्ट हैव टू डू सम काइंड ऑफ द वर्क। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन एक वर्ड होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि अगर बड़ा पैकेट है 1500 से, तो क्या करते हैं जो डिवाइसेस होती है, जैसे ये आपका 1600 का पैकेट आ गया, मान के चलो 1600 बाइट का, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देगा, 800 इधर हो जाएगा, 800 इधर हो जाएगा, तो 2 पार्ट में इसको भेज देगा पैकेट को, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 1500 से नीचे है इसका। लेकिन जब ये पैकेट मान के चलो कि पीछे से ये फ्रेगमेंट होकर आ रहा है और उसको रीअसेंबली की जरूरत है, तो वो रीअसेंबली भी ये करती है फायरवॉल की। मतलब कि अगर चंक में पैकेट्स आ रहे हैं और उसको लगता है कि नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बड़ा पैकेट, आफ्टर रिसीविंग दैट आई कैन रीअसेंबल देम ऑल टुगेदर, तो वो रीअसेंबली भी करता है। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो ये सारी चीजें भी करता है, बट ये जनरली बहुत रेयर केस में होते हैं। बट क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का भी अपना एक ड्रॉबैक है, अगर फ्रेगमेंटेशन एप्लीकेशन पैकेट्स होते हैं, अगर आपने सही से एमटीयू सेट नहीं किया तो कई बार आप नेटवर्क में प्रॉब्लम भी आते हैं, स्लोनेस वगैरह का। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप फ्रेगमेंटेड को आप सही से एमटीयू सेट करो। तो बेसिकली कहने का मतलब कि जब पैकेट आपके पास आया तो वो आपका एक्सट्रैक्ट किया लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, आपका इनग्रेस इंटरफेस इन जोन की इंफॉर्मेशन, और आपका कोई भी पैकेट का अगर फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली की जरूरत है तो वो भी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब पहले पैकेट रिसीव होता है तो क्या होता है। अब आगे देखो क्या होता है, जब इतना काम इसने चेक कर लिया, जब ये सारी इंफॉर्मेशन इसने ले लिया, तो अब ये पैकेट नीचे की तरफ आता है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो पैकेट इसने इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, इसके बेसिस पे कुछ वो एनालाइज करेगा, दिस इज गोइंग टू टेक सम काइंड ऑफ द एक्शन, लॉजिक कुछ तो लेगा वो, राइट। तो उस एक्शन के बेसिस पे वो फायरवॉल डिसाइड करता है कि ये जो पैकेट मैं रिसीव किया हूँ, ये पैकेट एक्चुअली वैलिड पैकेट है या इनवैलिड पैकेट है। अब ये कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो फायरवॉल क्या करता है, जो ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है इसके बेसिस पे पता करने की कोशिश करता है कि द पैकेट आई रिसीव, दिस इज द रियली गुड पैकेट और बैड पैकेट। अगर वो बैड पैकेट है तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा, मतलब आपका पैकेट यहीं पे डेड हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोसेस। लेकिन इट्स अ गुड पैकेट, राइट। बैड के केस में मतलब डिस्कार्डेड, अगर गुड के पैकेट में ये फिर आगे के स्टेप पे जाता है। ठीक है, तो होल्ड डाउन, यहीं पे अब हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि क्या ऐसी चीज होती है कि द पैकेट इज गोइंग टू बी बैड एंड द पैकेट इज गोइंग टू बी गुड। मतलब बैड का मतलब कि उसमें कुछ एरर है और गुड का मतलब कि सब कुछ सही है। तो क्या ऐसे पैरामीटर्स होता है, आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे आप। सो यू जस्ट हैव टू मूव डाउन इन द लास्ट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, सो देखो क्या क्या होता है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि पैकेट हैविंग सम एरर्स, तो उस एरर के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, ध्यान से समझो। मिसमैच ऑफ द इथरनेट टाइप एंड आईपी वर्जन। सो अगर आईपी वर्जन मिसमैच है, कहीं IPv4 यूज कर रहे हो, कहीं एप्पल टक यूज कर रहे हो, IPv6 यूज कर रहे हो, या इथरनेट का टाइप ISL.1 की जो इथरनेट टाइप्स होते हैं वो मिसमैच यूज कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्कएबल फॉर यू। सो आपका एंड टू एंड IPv4 यूज कर रहे हो तो IPv4 यूज होना चाहिए, आपका सेम इथरनेट वर्जन होना चाहिए। ट्रंकेटेड आईपी हेडर, मतलब कि एक आईपी का जो साइज होता है 32 बिट्स का होता है, अगर उसमें से किसी ने उसको शॉर्ट कर दिया, 30 बिट्स कर दिया है, 28 बिट्स कर दिया है, मैनिपुलेशन कर, तो वो सब पैकेट भी आपके नहीं एक्सेप्ट होते हैं, वो आपके बैड पैकेट से कैटेगरी में आते हैं, एरर पैकेट से कैटेगरी में आते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज कोई आईपी प्रोटोकॉल का नंबर 0 है, सो दिस इज डेफिनेटली इट्स नॉट द गुड। प्रोटोकॉल नंबर 0 कहीं इंटरनेट की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो पैकेट सही नहीं है, उसको आपको 0 करना पड़ेगा, मीन्स आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। किसी पैकेट की टाइम टू लिव, टीटीएल वैल्यू 0 है, बाय डिफॉल्ट हर एक पैकेट का टीटीएल वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर किसी का 0 है तो उस पैकेट को भी आपको बेसिकली नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, राइट। आप एक होता है लैंड अटैक।
अब देखो लैंड अटैक का मतलब क्या होता है। लैंड अटैक जो होते हैं ये बेसिकली आपका बेसिकली एक तरह से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। डॉस अटैक आपने सुना होगा, राइट? तो वो आपका लैंड अटैक की तरह, मतलब कोई अगर डॉस अटैक हो रहा है आपके, राइट, वो सब भी आपका एक तरह से आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर आपका पिंग ऑफ डेथ, मतलब पिंग ऑफ डेथ भी एक इसी तरह का डॉस अटैक का ही क्राइटेरिया है। मतलब ये दोनों जो पैरामीटर आप देख रहे हो, अगर डॉस, आगे हम बताएंगे डॉस अटैक कैसे होता है, इसका लाइव करके भी दिखाऊंगा कैसे पैकेट डेड किए जाते हैं। मतलब ये दोनों नहीं, सॉरी, ये दोनों आप देखोगे। सो दे फॉल अंडर द डॉस अटैक कैटेगरी। सो पिंग ऑफ डेथ एंड लैंड अटैक्स बोथ ही डॉस डॉस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको उनको पता चल जाता है फायरवॉल के कि दिस इज समथिंग फिशी, नॉट गुड, सो वो पैकेट को डिस्कार्ड वहां भी कर देंगे, राइट। फिर आपका एक मार्टिन आईपी एड्रेस होता है। अब मार्टिन आईपी एड्रेस को पूछ देगा तो क्या क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब ये होता है कोई ऐसी आईपी एड्रेस जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आईपी का रेंज है, क्या है? क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ए ई है। अब इसके रेंज के अलावा मान के मैं लिख देता हूं कि मेरी आईपी ये है 1000.1.1. क्या वैलिड आईपी है? नहीं आईपी, क्योंकि इस रेंज में फॉलो ही नहीं करता है। तो ये 1000.1.1 ये वैलिड आईपी नहीं है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2000.200.100.1 से, ये मार्टिन आईपी एड्रेस के कैटेगरी में आ जाता है। मतलब वैसी आईपी एड्रेस जो यूनिवर्स में कहीं बिलोंग ही नहीं करती है, दोज आईपी एड्रेस कैन बी ऑल्सो डिस्कार्ड। अगर वो पैकेट में ऐसी आईपी एड्रेस है तो उसको भी बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आईपी चेकसम एरर। सो अगर आईपी चेकसम में कोई एरर आता है, फायरवॉल को लगता है कि मैं चेकसम में एरर आ रहा है, तो उस पैकेट्स को भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे आपका पैकेट डिस्कार्ड हो सकता है इन पालो आल्टो फायरवॉल, राइट। यू जस्ट हैव टू हैव नो दिस पर्टिकुलर ऑल पॉसिबिलिटी। सो ये सारे पॉसिबिलिटी हैं जिसके बेसिस पे आपका पैकेट डिस्कार्ड हो सकता है, ठीक है। सो आप लोग इसको लिख सकते हो या आप लोग को डॉक्यूमेंट में मिलेगा, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो मान के चलते हैं कि हमारा पैकेट बिल्कुल सब सही है, मतलब 100% करेक्ट है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन माय पैकेट। तो जब मेरे पैकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? So the packet is not going to be discarded here. The packet is not going to be started because my packet is good. So ये अब नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या बोलता है कि फायरवॉल इंस्पेक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। देखो, अगर नो होगा तो आपका पैकेट इधर पकड़ लेगा रास्ता, ये वाला रास्ता। अगर यस होगा तो ये फिर से नीचे की तरफ आएगा। तब फायरवॉल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? एक एक चीज का आप लोग मसला समझो, बहुत बारीकी से मतलब समझो कि हर चीज का मतलब क्या होता है। तो फायरवॉल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मैं इंस्पेक्शन का वर्ड यूज करता हूं, तो मतलब कि जो आपका ये पैकेट रिसीव हुआ, तो फायरवॉल इसको इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट मतलब इस पैकेट को कंप्लीटली एनालाइज करेगा, हर चीज को। मतलब इसके लेयर 2 हेडर्स को भी करेगा, लेयर 3 हेडर्स को भी करेगा, लेयर 4 को भी करेगा, लेयर 7 को भी करेगा, इसके कंटेंट को भी करेगा, इसको यूआरएल को भी करेगा, इसको डिवाइस आईडी को भी करेगा, इसको यूजर आईडी को भी करेगा, इसकी और भी XYZ कुछ एडिशनल फील्ड होते हैं उसको भी करेगा, जो मैं आगे आप लोगों को पॉलिसी में दिखाऊंगा। तो इंस्पेक्शन का मतलब कि आपकी पैकेट को हर एक पैरामीटर्स को फायरवॉल चेक करेगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि नहीं, तुम्हें पैकेट को चेक नहीं करना है, तो ये फायरवॉल एक तरह से राउटर की तरह यूज होने लगेगी। मतलब क्या राउटर क्या करता है? राउटर करता क्या है कि जैसे आपका पैकेट आया इस इंटरफेस से, और ये इन है, ये आउट है, तो यहाँ से पैकेट आया और राउटिंग टेबल देखा और यहाँ से बाहर आ गया, और वो कुछ नहीं चेक करता, सिर्फ पैकेट को स्विच करता है। स्विच मीन्स कि मतलब आपका एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे आपको फॉरवर्ड करता है। तो दिस इज द नॉर्मल, इसमें कोई इंस्पेक्ट नहीं होता, इसमें कुछ भी आप इंस्पेक्ट नहीं करते हो, मतलब कोई भी आप पैकेट को खोल कर एनालाइज नहीं करते हो। बट अगर मुझे यही करना है तो फिर राउटर ही ना लगा लेता, फिर फायरवॉल की जरूरत क्या है? बट कई सारे ऐसे सिनारियो होते हैं जिसमें आपको फायरवॉल से ट्रैफिक को बाईपास करना होता है, टेस्टिंग को, तो इसमें भी हम इंस्पेक्शन नहीं अलाउ कर सकते। बट 99.99% केस में यू हैव टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ द पैकेट, क्योंकि फायरवॉल लगा रहे हो तो इंस्पेक्शन करोगे, गुरु क्यों नहीं करोगे आप? यू हैव टू डू दैट। सो देयर इज नो इफ एंड बट, आपको करना ही पड़ेगा फायरवॉल पे इंस्पेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपका जो फायरवॉल है
the firewall is going to inspect the packet, and if inspection is applicable, it is going to move next. अगर inspection नहीं अवेलेबल है तो सिंपली जैसे राउटर को बताया मैंने, ये फायरवॉल आपका इनग्रेस इंटरफेस से सीधा देखो आपका इग्रेस इंटरफेस में आ जाएगा। मतलब बीच के जो डब्बे हैं ना, जितने भी सारे कहानियां लिखी हुई हैं, ये सब कुछ नहीं होगा, सीधा इन से आउट चला जाएगा। जैसे राउटर यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, इन से आउट चला गया, ऐसे ही चला जाएगा पैकेट। मतलब सीधा ये बड़ी सी लाइन पकड़ेगा, देखो ध्यान से, इस लाइन को पकड़ा ऐसे ऐसे, देखो धीरे धीरे देखो आप लोग कैसे आ रहा पैकेट, यहाँ पे आकर और यहाँ से बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये एक तरह से राउटर के तरह काम करने लगेगा मेरा पैकेट। बट अगर इंस्पेक्शन हो रहा है तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मूव इन द नेक्स्ट स्टेज। सो लास्ट स्टेज ऑफ द इनग्रेस इंटरफेस, so last stage of the ingress interface is the IPsec SSL VPN tunnel packet. so inspection है। अब इसके बाद बोलता है कि जो पैकेट आपका रिसीव हुआ, अब ये पैकेट दो तरीके का हो सकता है। ये पैकेट दो तरीके का हो सकता है। पहला तरीका आपका हो सकता है, ये पैकेट जो आपका रिसीव हुआ, ये तरीका आपका पहला हो सकता है, ये पहला पैकेट आपको हो सकता है प्लेन टेक्स्ट, और दूसरा हो सकता है इनक्रिप्टेड। सो प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो नॉर्मल पैकेट होता है जिसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं होता, मतलब आपने सोर्स डेस्टिनेशन भेजा, आईपी पेलोड भेजा, वो हो गया। इनक्रिप्टेड पैकेट क्या होता है, जैसे आपका आईपीसेक के पैकेट्स होते हैं, ऐसे आईपीसेक में बनाते हो ना, तो उसमें पूरा पैकेट इनक्रिप्ट हो जाता है। आईपीसेक का पैकेट होता है, एसएसएल का पैकेट होता है, दोज पैकेट्स आर गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड, राइट, दोज पैकेट्स आर गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड। सो अगर प्लेन टेक्स्ट पैकेट हुआ, मतलब उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं है, तो क्या होगा, फायरवॉल उसको सिंपली आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई आपने पैकेट को इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब उसकी अंदर की इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया आपने, तो फायरवॉल फिर कैसे उसको इंस्पेक्ट कर पाएगी, तो पूरा उसका एनालाइज तो नहीं कर पाएगा ना फायरवॉल, तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो फायरवॉल क्या करती है कि अगर उसको लगता है कि मेरा पैकेट इनक्रिप्टेड आया है, तो उस फायरवॉल के पास एक डिक्रिप्शन इंजन होता है, इनग्रेस स्टेज में ही ऑलरेडी लगा होता है, उसको वहां भेज देती है कि भाई इसको ना तुम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो मैं इसको समझ नहीं पाऊंगा कि ये पैकेट के अंदर क्या है। अगर मान लेते हैं पैकेट लिया मैंने, इसको पूरा मैंने हैश कर दिया, पूरा इनक्रिप्ट कर दिया, राइट, तो अगर फायरवॉल को इसके अंदर की कहानी नहीं समझ में आएगी, अगर इसमें वायरस भरा हुआ है, इसके अंदर कोई डेटा लीक कोई कर रहा है, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी अटैक हो रहा है, तो फायरवॉल कैसे उसको समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी ना। तो इसके जितने भी इंक्रिप्शन लॉक्स है ना, इसको खोलना पड़ता है, तभी फायरवॉल समझ पाएगी। तो द लॉक्स शुड बी ओपन। तो अगर इनक्रिप्टेड पैकेट है तो उसको लॉक को ओपन करने के लिए उसको डिक्रिप्शन इंजन के पास भेजना पड़ेगा। अगर प्लेन टेक्स्ट है तो कोई बात नहीं, फायरवॉल को सब पता है, सब रीड कर सकती है। प्लेन टेक्स्ट है तो उसको दिख रहा है क्या इसमें सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, तुम क्या डेटा भेज रहे हो। बट अगर आपको इनक्रिप्ट कर दिया तो आपको डिक्रिप्शन के पास भेजना पड़ेगा। जैसे डिक्रिप्शन के पास आपने भेजा, ये डिक्रिप्शन इंजन उसको कन्वर्ट करता है फिर प्लेन टेक्स्ट में, फिर से पैकेट यहाँ पे आ जाता है लौट के दोबारा, और फिर से जो स्टेप अभी तक हुआ है फिर से पूरा रिपीट होकर फिर दोबारा पैकेट यहाँ पे आएगा। जब दोबारा पैकेट आएगा तो ये पैकेट अब बन जाएगा आपका प्लेन टेक्स्ट। तो ठीक है, प्लेन टेक्स्ट हो गया, तो फिर आगे की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज द इनग्रेस स्टेज, एक पैकेट की लाइफ साइकिल इन इनग्रेस स्टेज। एक ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। अब बताओ किसको क्या समझ आया और किसको क्या समझ नहीं आया, बताइए आप लोग। जैसा आप लोग बताएंगे वी कैन हैव अ डिस्कशन, क्योंकि अब आगे की चीजें हम आपको फिर कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार इंस्पेक्शन एप्लीकेबल के बारे में समझा दो सर। हाँ बता रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन? सर जैसे आपने बताया इनग्रेस स्टेज में पैकेट अगर अंदर आता है, अब वो ये सब प्रोसेस करने के बाद एक्सट्रैक्ट लेयर 2 लेयर 3 4 और ये सब कुछ करने के बाद अगर मेरा पैकेट इनक्रिप्टेड है और प्लेन टेक्स्ट रहता तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाता। मेरा पैकेट इनक्रिप्ट था तो उसने डिस्क्रिप्टर इंजन के पास भेज दिया, फिर उसने उस पैकेट को ओपन किया या खोल के प्लेन टेक्स्ट में नीचे भेज दिया। तो फिर हम उसको वो आईपीसेक मतलब पैकेट को इनक्रिप्ट करने की क्या जरूरत थी, प्लेन टेक्स्ट में भेज सकते थे ना सर। तो क्या फिर वो उसको क्या करते, लॉक नहीं करेगा क्या पैकेट को? नहीं, वो एक्चुअली जब पैकेट फायरवॉल में आया ना तो उसको उसने डिक्रिप्ट करके उसके अंदर की इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन अभी फायरवॉल से बाहर पैकेट नहीं गया है ना अभी तक, अभी नहीं गया, अभी तो फायरवॉल के अंदर ही है ना, अभी तो जस्ट आया है, अभी भेजा नहीं है ना। तो जब भेजेगा तो फिर मैं बताता हूँ क्या करेगा वो। अभी उस यहाँ समझो कि अभी तक यहाँ पे इतना ही काम किया, अभी आगे बहुत सारी चीजें बची हैं, अभी आगे अभी इग्रेस में देखेंगे क्या करता हो, ठीक है। तो अभी इतना ही मान के चलिए कि अभी इसको यहाँ पे इनक्रिप्ट है पैकेज, उसको डिक्रिप्ट करेगा, राइट।
बट डिक्रिप्ट करके उसको प्लेन टेक्स्ट में कर दिया तो भी तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या फिर से उसको डिक्रिप्ट, फिर से इसको इंक्रिप्ट करेगा? द आंसर यस करेगा। वो कैसे करेगा मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है? इस फायरवॉल को कैसे पता चलेगा कि पैकेट एनक्रिप्टेड है, कि उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसका अपना होगा? क्या अब फायरवॉल को कैसे पता चलेगा पैकेट इंक्रिप्टेड है? सो देखिए, फायरवॉल के पास एल्गोरिथम्स होती हैं, उसके पास खुद की अपनी एनालॉजी होती है। देखिए कोई भी पैकेट बनता है ना, देखिए तो इंक्रिप्टेड का मतलब ये नहीं होता। देखिए बताता हूँ आपको कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, क्योंकि हर बार ये रहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई पैकेट हम बनाते हैं ना, तो देखिए ये मेरा ओरिजिनल पैकेट हुआ। आईपी से जब बताऊंगा ना तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड में दीजिए आप लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो देखिए, देखिए ओरिजिनल पैकेट जो भी होता है, जो इनक्रिप्टेड से पहले, तो उसके अंदर जब मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन बस लिखता हूँ आपको, मान के चलिए कि ये पैकेट है, 3 इन्फॉर्मेशन बस लिख देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सोर्स आईपी होता है, इसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, और क्या होता है इसके अंदर? पेलोड होता है, ठीक है, जिसको डेटा बोलते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन होता है। ये ओरिजिनल पैकेट है, दिस इज नोन एज अ ओरिजिनल पैकेट। लेकिन जब आईपी से टनल आप यूज करते हो तो इसको क्या करते हैं? इस पैकेट को आप इनक्रिप्ट करते हो, मतलब इसके ऊपर एक बड़ा सा लेबल लगा देते हो, और इस पैकेट को आप बोलते हो एनक्रिप्टेड पैकेट। एनक्रिप्टेड पैकेट, ठीक है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या? अब 2 तरीके से इंक्रिप्शन होता है। अब इसमें भी लॉजिक होता है, जब आईपी से पढ़ेंगे तो एक इंक्रिप्शन होता है कि आपको सिर्फ पेलोड ही इंक्रिप्ट करते हैं और आपका हेडर हमेशा खुला रहता है। इसको हम टनल मोड और ट्रांसमोड मोड 2 तरीके से होते हैं। जब आईपी से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में आप लोग को। तो सिर्फ पेलोड को इंक्रिप्ट करते हैं कि डेटा मेरा कोई नहीं पढ़ सके। दूसरा इंक्रिप्टर होता है कि हम पूरा इंटायर पैकेट को ही इंक्रिप्ट कर देते हैं कि मेरा ना कोई आईपी देख सके, ना मेरा कोई डेटा देख सके, मतलब सब कुछ इंक्रिप्ट हो गया। और इस पे एक नया हेडर लगा देते हैं, एक नया हेडर लगा देते हैं। मतलब नया हेडर का मतलब कि आपका एक सोर्स आईपी यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी लग जाता है यहाँ पे, राइट सतीश? हाँ हाँ बताइए बताइए। और सर ये बोला था कि जैसे अभी ये अपने बाहर तो निकला है, अभी वो फायरवॉल में ही है अंदर ही, तो वो वीपीएन तो खुद एक अपने आप में एक खुद की सिक्योरिटी, मतलब टनल जब बना रहा है तो वो इंडिविजुअली मतलब खुद के लिए क्लाइंट से सोर्स के लिए बना रहा है। वो दूसरा राउटर उसको वीपीएन अगर है तो वो टनल बनाएगा, जब दूसरा कोई उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो क्या वीपीएन में भी तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो भी तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होता है? मैं आपको सत्यम थोड़े समय बाद इसको क्लैरिफाई करता हूँ। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है थोड़ा सा, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं तब मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं इसमें घुस जाऊंगा तो फिर ये बाकी जो क्वेश्चन मैं ले नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो मैं ये बता रहा था कमाल जी को कि अभी ये भी दोबारा बताना मुझे कि जब भी कोई पैकेट आता है तो उसमें ओरिजिनल डेटा कंटेंट होता है, दैट इज गोइंग टू बी इनक्रिप्टेड, या कंप्लीट पैकेट ही इनक्रिप्ट हो जाता है और नया हेडर लगेगा। तो आपका पैकेट जो होता है ना, स्विच होता है इसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे। लेकिन इसके अंदर की इंफॉर्मेशन फायरवॉल समझ नहीं पाती है। तो जब समझ नहीं पाती है कि इसके अंदर क्या है, तो वो अपने कंसल्टेशन लेती है डिक्रिप्शन इंजन से। इसके अंदर एक इंजन होता है जो इन सब चीजों को समझता है और उसको बोलता है कि भाई ये जो पैकेट मेरे पास आया है ना, दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट। क्योंकि आप साइड टू साइड वीपीएन जब बनाते हो, आपके जब पैकेट आते हैं वीपीएन से, तो आपका की होते हैं उस पैकेट को खोलने के लिए। तो इंजन के पास ऑलरेडी सारा की है, सारा मैकेनिज्म है, तो पैकेट को खोल लेता है और देख लेता है कि भाई क्या है। अगर आपके पास पैकेट आया और आपके पास की नहीं है, मतलब आपके पास इनक्रिप्टेड पैकेट आया और आपके पास की नहीं है, तो खोल ही नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब फायरवॉल से जब आप आईपी से पैकेट ले रहे हो, तो बट नेचुरल है कि आपने आईपी से टनल बनाया है। तो आईपी सेक्टर बनाया है तो आपके प्राइवेट पब्लिक इंक्रिप्शन सारी की आपके पास होंगी। तो जैसे ही पैकेट आया आप उसको खोल लिया कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, डिक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है की। तो इसलिए पॉलो अल्टो फायरवॉल उसको, या कोई भी फायरवॉल या कोई भी राउटर उसको डिक्रिप्ट कर लेता है पैकेट को, क्योंकि उसके पास एल्गोरिथम होती है, प्राइवेट पब्लिक की जो भी होता है, फेज 1 फेज 2 इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज गोइंग टू वेरी मच क्लियर कमाल जी इन द आईपी सेक टनल्स। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर? थैंक यू। हाँ सर आई हैव ए क्वेरी। एक मिनट आपकी क्वेश्चन लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेट मी जस्ट रिकैप द फायरवॉल इंस्पेक्शन, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन, ठीक है? सो फायरवॉल इंस्पेक्शन में ये बता रहा था कि जब फायरवॉल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम फायरवॉल लगाते हैं तो उस फायरवॉल में मतलब प्रोविजन होता है कि आपको पूरा पैकेट को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट का मतलब उसको पूरा एनालाइज करना है।
उसका लेयर 2 एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको बेसिकली उसमें एनालाइज करना है एंड यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करना है, मतलब आपको इंस्पेक्ट करना है पैकेट को, जैसे एसीएल आप बनाते हैं, एक्सेस लिस्ट क्या करती है, जैसे एक्सेस लिस्ट बनाते हैं एसीएल कंट्रोल लिस्ट, तो आपके सोर्स आईपी के बेसिस पे, डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे, राइट, आपका सोर्स पोर्ट के बेसिस पे, डेस्टिनेशन पोर्ट के बेसिस पे आपका पैकेट की जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारा चेक होते हैं, और एसीएल या तो उसको अलाउ करता है या उसको आपको ब्लॉक करता है। ठीक है, तो या तो अलाउ करेगा या तो आपको उसको ब्लॉक करेगा। दिस इज अगेन एसीएल इंस्पेक्शन, मतलब एसीएल आपको पैकेट को डीपली इंस्पेक्ट कर रही है। जैसे आपका एक जैसे एग्जांपल हुआ कि आप जैसे मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, राइट, तो दो सिनारियो हो सकते हैं कि आप मेट्रो स्टेशन पे गए और आपको सिंपली अलाउ कर दिया गया कि जाओ जी मेट्रो बोर्ड कर लो, आप अपने आप चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक्स नहीं है, तो वहां पे कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, कोई चेक्स नहीं हो रहे, राइट, आप सिंपली अलाउ हो जाते हो। लेकिन एक हो गया कि आपको वहां पे जाते हो, सिक्योरिटी पर्सनल्स आपके बैग चेक करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपको पूरा एक एक आइटम को चेक करते हैं, देन दे अलाउ टू गो। तो दैट दे आर डूइंग द इंस्पेक्शन, कि मतलब आपको पूरी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट करें, हर एक चीज को चेक करके देन दे आर अलाउड टू गो इनसाइड द मेट्रो या एयरपोर्ट या जो भी रेलवे स्टेशन है। तो सेम चीज यहाँ पे इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपको इंस्पेक्ट करना मतलब पूरी पैकेट को आपको एनालाइज करना, उसको समझना है, उसको देखना है, और ये चेक करना है कि मेरे एसीएल्स, मेरे पॉलिसी के खिलाफ तो पैकेट नहीं है, या उसके इनलाइन पैकेट है। इनलाइन है तो उसको अलाउ करना है, अगर उसके मतलब सपोर्ट नहीं करता या मतलब उसके रूल रेगुलेशन को अगर ये नहीं फॉलो करता उसको यहीं पे ब्लॉक कर देना है। ये होता है इंस्पेक्शन का मतलब। ठीक है सर, अब बताइए सर जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, राइट? सर हाँ बताइए। actually when you told that if there is an error in the packet, the packet will be discarded. So is there any way we can identify the firewall? Means generally if packet is permitted or denied, it will be so in the logs. But if the packet is discarded, how can we know the packet is actually Yes. discarded? Again, this is a very good question, right? So there is a method I'm going to tell you. Let me see if this firewall can be logged in. There is a method I will going to see you. Pre-praise match. There is one section. When you do the packet capture, we having the match criteria, right? So we having a pre-praise match criteria, right? So if you, I will show later stage because the firewall is not ready right timing. So let me see. Okay, no issue. If हाँ मैं आपको बताता हूँ कि there is a condition. This is the really advanced level troubleshooting, right? When you fail to identify the issue in debug and everywhere in a packet capture and you're not able to figure it out, not in debug you will definitely figure out, but if you're trying to do the packet capture in the Palo Alto Firewall, right? So there is a normally there is a normal scenario we do the packet capture. So in normal packet capture, if there is an error in my packet, so that is not going to be captured. That is not going to be captured. या So there is मतलब कभी कभी ऐसा ये आता है, मतलब इशू आता है जो हम यूजर का लॉग्स चेक करते हैं तो लॉग्स वी कैन नॉट सी, सो वो तो कैसे उसके लिए एक हमारे पास प्री प्रेज मैच होता है। इसलिए जब मैं ट्रबल शूटिंग कराता हूँ तो उसके बारे में स्पेशल बताता हूँ मैं कि अगर ऐसे सिनारियो कि यू नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरा पैकेट इनग्रेस स्टेज में ही ड्रॉप हो जा रहा है, तो इनग्रेस स्टेज में पैकेट ड्रॉप हो रहा तो कभी कैप्चर होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। एंड यू वांट टू कैप्चर दोस काइंड ऑफ द पैकेट्स, यू हैव टू इनेबल प्री प्रेज फिल्टर। So those filter is going to give the advanced view of the packet और वो ingress stage के बारे में बता देगी कि आपका पैकेट क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है सर, तो probably we'll see when we do the debug and all. ठीक है, let us test. But हाँ हमारे पास प्रोविजन है, we'll can check it. अच्छा वो टीटीएल ऑप्शन क्या कहाँ पे एक बताए थे टीटीएल? हाँ जैसे कोई एक पैकेट होता है, हर एक पैकेट बाय डिफॉल्ट होता है तो उसके अंदर टीटीएल वैल्यूज होती है, हर एक पैकेट का बाय डिफॉल्ट टीटीएल 1 होता है, राइट? सो अगर आपने हर एक पैकेट जो भी बनाते हैं उसको टीटीएल वैल्यू 1 होता है, राइट? जब भी पैकेट आता है तो अगर आप उसको 0 कर देंगे तो वो क्या होता है कि टीटीएल जैसे आपका एक होप से पैकेट जाता है यहाँ से तो दूसरे होप में गया तो एक टीटीएल लेकर गया तो फिर इसको रिटर्न रिप्लाई करता है, तो फिर इसको अगर दूसरे होप पे जाना है तो टीटीएल इसका 2 हो जाता है, फिर ये 2 होप रिप्लाई करता है, फिर ये टीटीएल इस तरह से काम करता है। तो अगर टीटीएल 0 होगा तो फिर आपका ये पैकेट एक जगह से दूसरी जगह आपका जा ही नहीं पाएगा, फिर आपका पैकेट डेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है,
तो अगर आप लोग राउटिंग स्विचिंग थोड़ी बहुत आती होगी, मतलब ऑलमोस्ट आती होगी आप लोगों को, तो उसमें टीटीएल का ट्रेस राउट में कैसे काम करता है वो आप लोगों को बड़े अच्छे से आप लोग देख लेना, ट्रेस राउट वर्क, तो उसमें टीटीएल का कॉन्सेप्ट पूरा आता है, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बीजीपी अगर आपको आता है तो बीजीपी में टीटीएल का बहुत क्लियर मतलब इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि बीजीपी में कैसे टीटीएल वैल्यू आपकी काम करती है। ओके ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सर आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज कोई आईपी पैकेट रिसीव हुआ तो उसमें तो इनक्रिप्टेड होता है और ऑथेंटिकेशन होती है, डीएच ग्रुप होते हैं मल्टीपल। Okay, so how Palo Alto will identify that which encryption and authentication is used on the packet? Okay, so again it's a good question. So आप इसे समझिए कि let me just use this one. कि देखिए आपको पहले इस बात को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि Palo Alto पे IPsec का पैकेट आएगा ही क्यों, मतलब ये बात तो समझना पड़ेगा ना कि Palo Alto पे IPsec पैकेट कैसे आ सकता है। ये फायरवॉल है या कोई भी डिवाइस है, तो इसके पास क्या क्या सिनेरियो हो सकती हैं। देखो ये फायरवॉल्स कैन बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, ये फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। आपकी कोई दूसरी साइट से है, यहाँ भी आपका Palo Alto फायरवॉल लगा हुआ है, राइट, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे लैन सबनेट्स हैं जहाँ पे आपको यूजर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भी आपका लैन सबनेट है, आपके भी यूजर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को बात करना है, ये यहाँ पे आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, राइट, यहाँ पे भी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बोथ हैविंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, यहाँ भी आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। सो द प्रॉब्लम इज कि यू कैनॉट टॉक प्राइवेट टू पब्लिक। सो अगर आपको यहाँ से जाना है, इससे आपको प्राइवेट टू प्राइवेट बात करना है, तो आपको किसके थ्रू बात करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू क्रॉस वाया द पब्लिक। बट द प्रॉब्लम इज कि आप प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक इंटरनेट पे राउट नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट राउट दैट प्राइवेट आईपी एड्रेस ओवर द इंटरनेट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो आप चाह के भी ये दोनों के कम्युनिकेशन नहीं बना सकते हो बॉस, यू कैन नॉट डू दैट ओवर द इंटरनेट। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, फिर आपको एमपीएलएस लेना पड़ेगा। एमपीएलएस इज नॉट गुड सोल्यूशन, बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर इंटरनेट के थ्रू ही आपको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक टनल बनानी पड़ेगी, वीपीएन टनल। तो जब आप वीपीएन टनल बनाते हो, सो ये वीपीएन टनल ही आपके साइड टू साइड वीपीएन इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आईपीसेक टनल बन गए आपके। तो जब आईपीसेक टनल यहाँ पे आपने बना दिया, तो ये इंटरफेस जब पैकेट रिसीव करेगा, या ये इंटरफेस पैकेट रिसीव करेगा यहाँ से यहाँ, या फिर पैकेट ये घूम के यहाँ पे आएगा, तो दे ऑलरेडी नो कि मैं आईपीसेक टनल हूँ, और जो मैं पैकेट रिसीव कर रहा हूँ वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, क्योंकि आप भेज ही रहे हो इनक्रिप्टेड, तो उसके पास ऑलरेडी की एल्गोरिथम रहती है। आपके पास यहाँ पे की रहती है, जैसे आप हैशिंग करते हो, डिफी हेलमैन ग्रुप चलाते हो, जिसपे आपकी पूरी की मैपिंग होती है, और आपका जो MD5 ऑथेंटिकेशन होता है, वो सारे आपके सारी पैरामीटर्स इस पे लगते हैं, तो वो उसको हेल्प करते हैं। ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फायरवॉल इटसेल्फ इज गोइंग टू डिक्रिप्ट द पैकेट। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपका पैकेट नॉर्मल है। अब नॉर्मल किस केस में आएगा, ये फायरवॉल है, पीछे राउटर से कनेक्टेड है, और यहाँ से कोई लैन लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से कोई पैकेट भेज रहा हूँ, मान के चलो कि यहाँ भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, यहाँ भी प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो ये पैकेट तो प्लेन पैकेट हुआ ना, तो इसको फायरवॉल को डिक्रिप्ट करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्राइवेट पैकेट हैं, तो इसको डिक्रिप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल पैकेट आ रहा है। बट द मोमेंट यू हैव टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ओवर द इंटरनेट थ्रू द आईपीसेक, फायरवॉल को पहले से ही पता है कि ये वाला इंटरफेस तो मेरा आईपीसेक है, तो जब भी पैकेट आएगा तो डिक्रिप्शन में लग जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, फायरवॉल को आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, सही से आईपीसेक टनल बनानी है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एंड आई विल टीच यू द वेरी लेमन लैंग्वेज, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और 2-3 चीजें उसमें आप लोगों को केयर करनी है, जो मैं नोट्स बनवा दूंगा कैसे आप लोग के होते हैं, एंड आप लोग को कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से सर निशांत जी, आपका जो आईपीसेक है, द फायरवॉल इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। और रही बात डीएससीपी एंड ऑल, सो डीएससीपी एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, दे आर द कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। इफ यू टॉक अबाउट दिस इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस, उनका अलग ही डोमेन होता है काम करने का। सो वो आईपी देने के लिए यूज होते हैं, ऑथेंटिकेशन जैसे डिवाइस ऑथेंटिकेशन होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, तो उनका इंजन अलग होता है। सो दे आर नॉट बेसिकली रिलेटेड टू दिस आईपीसेक टनल। निशांत जी, मेक सेंस? Yes, sir. Sure. Thank you. So I hope you guys are happy till now. So let me move next stage. Okay. So मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ बताइए।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मदन जी। सर जो आपने बताया था ये जो पैकेट फ्रैगमेंट पैकेट होता है जो उसको तोड़ देता है छोटे छोटे भागों में, जो वाइट का जो आता है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है? हाँ, आप कम कर सकते हैं। ज्यादा तो बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस जो होते हैं, जब तक आपका कुछ इंटरफेस जंबो फ्रेम को सपोर्ट करते हैं कुछ डिवाइसेस, बट जो सिस्को के नॉर्मल पालो अल्टो फायरवॉल्स होते हैं या मेजोरिटी ऑफ डिवाइसेस दे सपोर्ट मैक्सिमम ट्रांसमिशन विद 1500 बाइट्स ओनली। उससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, मैक्सिमम होता है, उससे कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं करोगे आप। ओके, हाँ, तो जो 1500 पैकेट को ज्यादा नहीं। तोड़ दिया हाँ हाँ, फिर भी बताइए क्या पैकेट को दोबारा पूछिए आप। आपने बताया सर पैकेट को जो फ्रैगमेंट पैकेट जो आता है उसको वो तोड़ देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, क्या फिर से वो उसको एक एक करता है सर, कंबाइन? हाँ, फ्रेगमेंटेड का मतलब ही होता है कि उस पैकेट को चंक्स में डिवाइड कर देना, और रीअसेंबली का मतलब होता है कि फिर से उसको ऐड कर देना, यही मतलब होता है। जी। फ्रेगमेंटेड का मतलब कि आपने उसको तोड़ दिया, रीअसेंबली में उसको जोड़ दिया आपने। ठीक है, ओके ठीक है। ओके। सो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इधर की जो चीजें हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अभिषेक बताइए। बोल रहा हूँ हाँ जी अभिषेक जी सर। बताइए। हाँ सर, ऐसा जैसे आपने बताया कि 1500 पैकेट्स एम्प्टी साइज है ना, तो हाँ 1500 का एम्प्टी साइज होता है। तो सर हाँ मतलब जैसे कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि हमारे जीबी में भी लिंक्स होते हैं, राइट? हाँ तो सर वो जीबी में लिंक्स होते हैं, तो फिर ये अगर हमने पैकेट लिमिट कर दिया है कि 1500 एम्प्टी साइज होगा, तो हाँ। सर फिर वो कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट होंगे? गुड क्वेश्चन। मतलब बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन आपने पूछा है। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल आंसर ही है। देखो मतलब कहने का मतलब ना कि आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि देखो पैकेट का साइज, कहने का मतलब स्पीड से और साइज से दोनों का ना अलग अलग रिलेशन है। तो मतलब ये है कि जैसे आपका कोई भी कंपनी होती है तो उसका एक बैंडविड्थ आप डिफाइन करते हो, राइट? सो ये एक इंटरफेस है, तो आपने बोला कि ये इंटरफेस, राइट, ये इंटरफेस पे आप 100 Mbps का सेलेक्ट, 100 Mbps, राइट, बीपीएस, एमबीपीएस। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एमबीपीएस। तो इसका मतलब होता है कि मतलब 100 Mbps सेकंड में सर्किट आपके 100 पास है, एक एमबीपीएस। सेकंड में आपका 100 Mbps मतलब पर सेकंड आपका पैकेट ट्रांसमिट हुआ, राइट? तो इतने पैकेट्स होंगे, राइट, इतने पैकेट्स आपका मतलब ट्रांसमिट होंगे एक सेकंड के अंदर। बट तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पैकेट का साइज आप मतलब 1500 से ज्यादा कर दो, तो फिर वो आएगा ही नहीं ना। मतलब आपका कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अब एक मान के चलो रेलवे का ट्रैक है, जैसे मान के चलो ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, आप बोलते हो ना। अब इस रेलवे ट्रैक की कैपेसिटी है कि ये रेल, इस रेल ट्रैक पे आपका 100 Mbps की स्पीड से ट्रेन चल सकती है ना। तो आप ऐसा कोई रेल ना बना दो कि जिसके डब्बे जो हैं जो 2 किलोमीटर तक लंबे हो, 3 किलोमीटर तक लंबे हो, तो कैसे चल पाएगी फिर वो? फिर तो वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो पैकेट बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे हो ना। तो वो हर चीज का एक लिमिटेशंस होता है। तो जो जब IEEE कोई डिवाइस बनाती है, कोई आर्किटेक्चर बनाती है, तो उसका एक प्री डिफाइन करती है कि इतने साइज के ही पैकेट होने चाहिए, तो ये पर्टिकुलर स्पीड सपोर्ट करेगा आपका। तो मतलब 1500 से लेस के या इक्वल टू जो पैकेट्स होंगे, अगर वो आएंगे तो आपको वो स्पीड मिलेगा। अगर उससे ज्यादा आते हैं तो उसको चंक में तोड़ देगा, फिर वो स्पीड तो मिलेगा आपको, लेकिन दैट इज गोइंग टू, तो वो आपका पैकेट साइज के बारे में बात कर रहा है, स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो स्पीड सर जस्ट वो जैसे ना फिर ये होता है कि पैकेट ड्रॉप आने लगते हैं। नहीं, पैकेट ड्रॉप पैकेट तब ड्रॉप आएंगे। होने लगते हैं। पैकेट ड्रॉप तब आएगा जब आप, जैसे आप टेस्ट करते हो, तो आपने आपके नेटवर्क में अगर आपने फ्रेगमेंटेशन इनेबल नहीं है, डिवाइस आपको फ्रेगमेंटेशन सपोर्ट नहीं करती है, तो अगर आपने हायर एमटी से पिंग लगा, आप यही बोलो ना कि पिंग करते हैं, पिंग जैसे 1.1.1 साइज आपने लगा दिया, जैसे 1560 लगा दिया, ये आप करते हो, तो आपको ड्रॉप आने लगा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपके इंटरफेस जो होते हैं ना, वो आपको 1500 से ऊपर के पैकेट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और उनके पास फ्रेगमेंटेशन का भी या जंबो फ्रेम का सपोर्टेबिलिटी नहीं है। सिस्को के राउटर में या फायरवॉल में अच्छा आपको सर, मतलब आप हर ये कह जगह रहे में। हो कि जैसे 1500 से ऊपर की साइज होगी तो उसको हाँ, फ्रेगमेंटेशन में चला जाएगा वो, अगर डिवाइस उसको सपोर्ट डिवाइड करती हो, करेगा। अगर सपोर्ट करती होगी तो सब्जेक्टेड टू सपोर्टेबल डिवाइस, या कुछ जंबो फ्रेम को डिवाइस सपोर्ट करती होगी तो, नहीं तो इट अगर इज, नहीं सपोर्ट
तो आपका पैकेट तो ड्रॉप हो ड्रॉप जाएगा। हो जो जाएगा। हाँ, जैसे आप राइट। पिंग करते हो ड्रॉप होता है ना, आप लोग करके देखना। अभी हम्म किसी को राउटर है तो आप एक काम करना है, आप 2000 साइज का पैकेट भेज देना। अगर नहीं सपोर्ट कर रहा होगा तो आपका पूरा ऐसे 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 आने लगेगा, राइट ठीक है, राइट, ऐसे होता है ऐसे सर, ऐसे आने होता है। लगेगा, होने लगेगा ना। तो दीज ऑल हाँ। आर लाइक बिल्कुल रियल टाइम क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट कॉन्सेप्ट इज दिस, ठीक है अभिषेक जी। राइट सर, राइट। हाँ, मतलब एक बार में 1500 साइज का ही पैकेट जाएगा, है पैकेट ही ना? जाएगा। हाँ, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, अच्छा, जूनिपर लेकिन के सर, होते हैं, कुछ जैसे डिवाइसेस है। मतलब अभी भी मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे हम्म 1500 साइज हुआ, ठीक है, तो वो हम्म जीबीपीएस जैसे होता है कि मान लो हमने 10 जीबीपीएस का साइज ले रखा है आईएसपी से, तो उसकी साइज हम्म। तो बहुत बड़ी होगी ना, 1 सेकंड में उतनी बड़ी पैकेट जाएगी। जाएगा, तो लेकिन आपका एक रूल है कि उससे बड़ा पैकेट नहीं भेज सकते हो। तो आप पैकेट जितना मन चाहे उतना भेज सकते हो, लेकिन साइज आपका जो है उतना ही होगा, नहीं एक सेकंड सर, में। जैसे मतलब कि 1 सेकंड में तो एक, मान लीजिए 1 सेकंड है, ठीक है, तो हाँ। उतना उतना बड़ा साइज जो है वो 1 सेकंड में ट्रांसफर होना है, राइट? तो वो तो उतनी बड़ी साइज जाएगी ना, अगर हमने उस एमबीपीएस या वो उस जीबीपीएस का बैंडविड्थ ले रखा है तो। अच्छा, आप इस तरीके से समझो, ठीक है, अब एक मैं और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो आप पैकेट ठीक है। जितना मन जैसे जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें इसमें समझो, मेट्रो का आपने गेट देखा होगा ना आपने, इस तरीके से, ठीक है। हम्म अब इस मेट्रो के गेट से या कोई भी ऐसा गेट है, आप बोलते हो कि जी इस गेट से अगर आप दौड़ते हुए आओगे और आपकी लेंथ जो है 10 फीट की है, तो आप 100 MPS की स्पीड से आप इसको, जितने लोग आओ आपको एक्सेप्ट करते जाऊंगा, पार करते जाओगे। आप आते जाओ, ये हम्म मेरी पाइप है, एक साथ 10 लोग पार कर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेट्रो का गेट है हम्म मेरा, या कोई भी लोकेशन का गेट है, 10-10 फीट के आप लोग हो, आप पार हो जाओगे। अब राइट। सडनली कोई कोई 12 फीट का बंदा आ गया यहाँ पे, अभी गेट क्या करेगा? अब दो 12 फीट के लोग आ गए, ये ड्रॉप हो जाएंगे ना, कैसे पार करेंगे गेट को? तो योर पाइप हैविंग ए कैपेसिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर पाइप हैविंग ए कैपेसिटी एक्सेप्ट मेनी पैकेट्स जिनकी साइज कितनी है, 1500 है, तो वो हम्म सबको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ज्यादा, जहां ज्यादा बड़ा हुआ उस पाइप के पास कैपेसिटी नहीं कि उससे ज्यादा बड़े पैकेट को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर एक साथ लाखों में पैकेट्स आ रहे हैं, उनकी साइज 1500, तो उनको सबको जाने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास कैपेसिटी है। लेकिन कुछ पैकेट्स अगर बड़े आ गए तो उनको ड्रॉप भी कर देगा वो। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है बेसिकली स्पीड एंड थ्रूपुट का कॉन्सेप्ट बेसिकली, जिसमें अच्छा, आपको ये सारी, मतलब इसमें बैंडविड्थ अलग हो गई, वो वाली साइज अलग हो गई, हाँ, वो राइट? साइज अलग हो गई। तो अब ओके। इससे बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ बेंचमार्क बनाया गया है, अगर उससे आप क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो आपके एक ही पैकेट क्यों ना है, लेकिन वो ड्रॉप होगा। लेकिन अगर आप इक्वल साइज में आओगे तो इट इज गोइंग टू बी बॉम्बार्डिंग। आप जाओ ना, 200 MPS, 500 MPS, 1000 MPS, जितना एमबीएस जाना जाओ, 1 Gbps जाना जाओ, 1000 MPS से 1 Gbps, तो आप जा सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम। मतलब नंबर ऑफ पैकेट हो गया कि नंबर ऑफ हाँ, पैकेट आप उतना ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पैकेट की जो लेंथ है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो नहीं बड़ी होनी चाहिए, राइट। राइट दिस सर, इज द ओके इंडिविजुअल सर। पैकेट, ठीक है। ओके। ओके, सो लेट्स मूव। आई थिंक आज हमें लगता है कि हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है, इट्स गुड, हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे इसको, बट लेट्स अंडरस्टैंड। सो अब हमारा क्या हुआ कि हम, मेरा पैकेट यहाँ से आया, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब इस पैकेट को जब यहाँ पे आ गया, सो पैकेट, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी 99% इट इज गोइंग टू आस्क इन द इंटरव्यू, ठीक है। इसको ध्यान से समझना आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो अब क्या होगा कि पैकेट जब भी फायरवॉल के इनग्रेस स्टेज को क्रॉस करता है, दिस पैकेट इज गोइंग टू लैंड इन फास्ट पाथ। वो फायरवॉल पैकेट कहाँ भेजता है? वो फास्ट पाथ में जाता है। ये सारा चीज चेक होने के बाद, फायरवॉल इंस्पेक्शन अगर एप्लीकेबल है तो, आईपीसेक चेक हुआ, एसएलवीपीएन चेक हुआ, राइट, तो वो फास्ट पाथ में जाता है। तो फास्ट पाथ में जाने के बाद पैकेट क्या करता है, राइट? तो जब भी फास्ट पाथ में जाता है पैकेट, द फायरवॉल इज गोइंग टू चेक, डू यू हैव एनी सेशन, सेशन लुकअप। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन लुकअप। सेशन लुकअप का मतलब होता है कि वो एसीएल चेक करेगा, पॉलिसी चेक करेगा, मतलब वो एक्सीएल पॉलिसी चेक नहीं करेगा, मतलब उसी के बेसिस पे आपके फायरवॉल पे सेशन चेक करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रीवियस सेशन में कि हमारे पास 2 तरह की फायरवॉल होती है, एक स्टेटलेस होती है, राइट, और एक हमारे पास स्टेटफुल होती है, राइट। सो जितने भी स्टेटफुल फायरवॉल होती हैं, वो क्या करती है? वो मेंटेन करती है सेशन।
जो भी हमारे पास स्टेटलेस फायरवॉल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेशन मेंटेन नहीं करते हैं, सिंपल ACLs को या पॉलिसी को उनके पास एक एंट्री होती है। तो जब भी कोई पैकेट नया आता है स्टेटलेस फायरवॉल के पास, तो हर बार जाकर वो पॉलिसी को चेक करता है, हर बार जाके वो ACL को चेक करता है। लेकिन अगर मैं स्टेटफुल फायरवॉल की बात करता हूँ, राइट, स्टेटलेस में हर बार चेक करता है। जो स्टेटफुल फायरवॉल होती है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सो दीज फायरवॉल्स बेसिकली नॉट ऑलवेज गो एंड चेक इन ACL एंड पॉलिसी। इसके पास भी ACL एंड पॉलिसी सेम ही होता है, ACL नहीं बोलते हैं, बेसिकली वी कॉल्ड अ पॉलिसी, बट आप समझो ACL पॉलिसी होता है। तो उसको एक बार जरूर चेक करेगा, बट आफ्टर चेकिंग वन टाइम दे क्रिएट वन सेशन फॉर एवरी पैकेट। जो भी पैकेट आएगा, once they are going to check the ACL and policy, they going to create one new session, create a new session. So अगर वो पैकेट मेरा पहली बार फायरवॉल में आया है तो बट नेचुरल है उसके पास कोई सेशन होगा नहीं। अगर कोई वेरी न्यू पैकेट आया, फर्स्ट टाइम पैकेट आया, राइट, तो उस फर्स्ट टाइम पैकेट के लिए मेरे पास कोई भी सेशन अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी सेशन। आप लोग अग्री कर रहे हो मेरी बात से? क्योंकि अगर मैं नया आया हूं तो मेरे को फायरवॉल के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या सेशन बना लेगा? तो नहीं बनाएगा। तो अभी मेरा पैकेट बिल्कुल नया है, दिस इज वेरी न्यू पैकेट, एंड वंस इट इज गोइंग टू लैंड इन द फास्ट पाथ, तो वो चेक करने की कोशिश करेगा कि सेशन है क्या पर्टिकुलर मेरे लिए। तो उसको मिलेगा आंसर इज नो, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो बॉस, हाउ यू कैन फाइंड द सेशन? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे जाएगा सेशन लुकअप के बाद सेशन मैच फाउंड, तो आंसर इज नो। तो जैसे ही आंसर नो बनेगा, तो अब ये सेशन क्रिएट करने के लिए अब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इनग्रेस स्टेज के बाद आपका पैकेट, दिस इज रियल इंटरव्यू क्वेश्चन, आपका स्लो पाथ में जाता है या फास्ट पाथ में जाता है पैकेट? So the answer is always yes. You are absolutely right. Always packet is going to land in the fast path. And after the fast path, if you don't have a session for the new packet, it always go in the slow path. तो अब आपसे पूछा जाएगा कि स्लो पाथ का क्या काम होता है एंड फास्ट पाथ का क्या काम होता है, राइट? सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि स्लो पाथ का मतलब क्या होता है एंड फास्ट पाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अभी तक हम ये समझे कि मेरे फायरवॉल में सेशन लुकअप के लिए आया एंड आई डोंट हैव एनी सेशन इन माय फायरवॉल, सो द फायरवॉल हैज शिफ्टेड द पैकेट इन द स्लो पाथ। अब स्लो पाथ में जब पहली बार फायरवॉल आया पैकेट लेके, तब वो क्या करेगा कि वो अब जाकर आपका ACL पॉलिसी, ये यहाँ पे 3 चीजें चेक करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब ये स्लो पाथ में आता है तो पहली चीज आपकी राउटिंग चेक होती है, ध्यान से ये लिख लेना थंब रूल एकदम बनाकर। दूसरी नेट होता है चेक, तीसरा आपका पॉलिसी होता है चेक। 3 ही चीज चेक होती है और पूरी फायरवॉल 3 चीज पे ही सिर्फ चलती है। अगर ये आपको दिमाग में अगर बैठ गया कि मुझे हर ट्रबल शूटिंग में 3 चीजें चेक करनी है, ट्रस्ट में आपका 99% सारी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएंगे। 99%, बिकॉज द पॉलिसी हैविंग एवरीथिंग। नेट इज जस्ट फॉर द नेट ट्रांसलेशन, सोर्स डेस्टिनेशन डुअल और आपका यूटर्न नेट। राउटिंग वो आपको जो चाहिए चाहिए। तो इन तीनों के बिना आपका कुछ काम हो नहीं सकता है, आप इससे बच नहीं सकते हो और आप एक अच्छा फायरवॉल इंजीनियर बन नहीं सकते हो, ट्रस्ट में। तो आपको इन तीनों को हमेशा अपने फिंगर टिप्स पे रखना पड़ेगा जब भी ट्रबल शूटिंग करने जाओ। डू हैव राउटिंग, अपने आप से पूछो, पहली चीज ये चेक होती है डू हैव नेट, तीसरी डू हैव अ पॉलिसी। अगर ये तीनों चीज आपने फिगर आउट कर लिया तो आपकी ट्रबल शूटिंग 100% करेक्ट होगी। ठीक है, तो जब ये पैकेट स्लो पास में आता है, स्लो पास में आता है, सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ सेशन। सेशन क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि आपकी ACL पॉलिसी, नेट, राउटिंग सबसे कंसल्ट करेगा एंड कंसल्ट करने के बाद द पैकेट इज गोइंग टू क्रिएट अ सेशन। सो आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला राउटिंग चेक करेगा कि मेरे पास राउट है कि नहीं। मेरे पास अगर मैक बेसिस कम्युनिकेशन है, डू आई हैव द लेयर 2 फॉरवर्डिंग लुकअप, मैक एड्रेस टेबल है कि नहीं, कैम टेबल है कि नहीं है, उस पे कौन से इंटरफेस से मेरा पैकेट आ रहा है, उस पे जोन क्या है, राइट? दीज ऑल आर गोइंग टू बी चेक्ड, दीज ऑल आर गोइंग टू बी चेक्ड। एंड उसके बाद वो नेट चेक करेगा, क्या मेरे पैकेट में नेट है, सोर्स नेट है, डेस्टिनेशन नेट है। अभी दोनों का अलग मतलब होता है, तो मैं इसको सेपरेटली आप लोगों को बताऊंगा। ये मैं आप लोग को सेपरेटली बताऊंगा, बहुत ही कैची एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेट का। सोर्स नेट तो इजी है, बट डेस्टिनेशन नेट बहुत ही मतलब कि एक ऐसी चीज है कि जो मतलब जितने फायरवॉल इंजीनियर होते हैं, मैं
बोल सकता हूँ क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं डेस्टिनेशन नेट जहां बात आती है वहां पे, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें देखो स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है कि इफ डेस्टिनेशन नेट इज प्रेजेंट इन द मैच रूल डू द सेकेंड लुकअप फॉरवर्डिंग एंड गेट द रियल फाइल। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर इसमें हम जाएंगे तो यू गाइज विल बी कंफ्यूज। तो अभी आप ये समझो कि आपका सेशन सेटअप का जो काम है जो स्लो पाथ में, वो आपको राउटिंग चेक करेगा, नैट चेक करेगा, जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों है। सोर्स के बारे में लिखा हुआ नहीं है बाय डिफॉल्ट, इसमें अंडरस्टैंडेबल है। तीसरा जो है पॉलिसी, ये तीनों चीज मैच करेगा इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए। अगर तीनों चीजें मैच होती हैं, अगर आपकी उस पर्टिकुलर पैकेट के लिए राउटिंग भी अवेलेबल है, आपका नैट पॉलिसी भी अवेलेबल है, एंड आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी अवेलेबल है। सो इफ ऑल थ्री आर गोइंग टू मैच एंड एक्शन इज अलाउ, तब तो पैकेट आपका एक नया सेशन क्रिएट करेगा। देन योर पैकेट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सेशन। अगर नहीं, तीनों में से कोई एक चीज नहीं मैच करती है, तो आपका पैकेट आपका यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपका पैकेट स्लो पाथ में ही डिस्कार्ड हो जाएगा, ये कभी फास्ट पाथ में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी सारी चीजें मैच कर गई, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सेशन, एंड ये सेशन जाकर आपका सेशन टेबल में आपका इंस्टॉल हो जाएगा, सेशन टेबल में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली अब स्लो पाथ का क्या काम हुआ, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, द स्लो पाथ इज गोइंग टू क्रिएट न्यू सेशन which is going to install in the fast path for any new packet। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई भी अगर मेरे पास नया पैकेट आता है, उसके लिए मेरे पास सेशन नहीं है, it always forward to or move to the slow path, and slow path having a responsibility to create the new session based on the three parameters: routing, NAT, and policy. If all three is going to be matched, I'm going to create a session and I'm going to install in the again fast path। ठीक है, तो स्लो पाथ का डेफिनेशन आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कि स्लो पाथ का काम क्या है? कोई ऐसा है जिसको लगता है स्लो पाथ नहीं समझ में आया मुझे? और स्लो पाथ में कब पैकेट जाता है? ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब स्लो पाथ में मेरा पैकेट आया, अब यही पैकेट दोबारा से आता है। अब यही पैकेट मेरे पास दोबारा से रिटर्न होगा। एक बार हो गया, मैंने सेशन क्रिएट कर दिया, कम्युनिकेशन मेरी हो गई। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि दिस पैकेट अगेन कम टू मी। तो जब ये पैकेट आएगा मेरे पास दोबारा सेम पैकेट, तो मेरे पास ऑलरेडी सेशन लुकअप करेगा, तो सेशन ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो इस बार सेशन लुकअप में उसको यस मिलेगा, और जब इसको यस मिलेगा तो दिस पैकेट इज नेवर गोइंग टू बी फॉरवर्डेड टू द स्लो पाथ। तो फास्ट पाथ में तभी पैकेट स्टे करता है सर वेट सर, बताइए। सर ये स्लो पाथ में तीनों पॉलिसी जो तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद, और ACL में फिर ये जो सेशन के मतलब सत्यम, आपके यहाँ से नॉइज आ रही है? आप नहीं सर, मेरा आवाज नहीं। अच्छा ठीक है, मैं म्यूट कर दिया। आप बताइए किसी और के यहाँ से है। हाँ तो सर ये जब और तीनों सेशन जब ये राउटिंग एंड नेट पॉलिसी जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें स्लो पाथ में, फिर ये तीनों स्टेप चेक होने के बाद अपना सेशन क्रिएट करेगा ACL पे, फिर देन ये फिर से पैकेट इंटीग्रेशन प्रोसेस में चला जाएगा, या फिर जस्ट मूव हो जाएगा फास्ट? नहीं, समझो, मैं बोल रहा हूँ कि जब पहली बार आप आओगे मेरे पास, एक मिनट रुको, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ अभी, एक सेकेंड, मेरे को एक स्लाइड खोलनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो, ये यूजर है, देख रहे हैं आप, ये वाला यूजर है। ये यूजर अगर मान के चलो कि ये यूजर है, मान के चलो आप, ये यूजर पहली बार आया, इसको जाना है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जब ये यूजर पहली बार आया, इसको इंटरनेट एक्सेस करने जाना है, तो ये फायरवॉल पे आएगा। तो इस फायरवॉल के पास ये टेबल, स्टेट टेबल इसका नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है, राइट। तो ये जाएगा कहाँ पे? स्लो पाथ में जाकर ये पॉलिसी चेक करेगा कि मेरे पास पॉलिसी है कि नहीं है, मेरे पास राउटिंग है कि नहीं है, मेरे पास नैट है कि नहीं है। तीन चीज चेक करेगा, पॉलिसी, राउटिंग एंड नैट। तो अगर ये बोलता है कि हाँ तीनों चीजें हैं, तो वो चेक करने के बाद क्या करेगा, इसको अलाउ कर दे, तुम जाओ इंटरनेट पे। तो चला गया चेक करने के बाद, लेकिन सेम टाइम एक सेशन क्रिएट करके ये इसमें इंस्टॉल कर दिया, जो फास्ट पाथ के लिए हो गया। तो जब सेशन आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, जब आपका सेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो क्या हो गया
कि जब अगली बार आप दोबारा आओगे तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा चेक करने के लिए, अब ये यहाँ से आएगा, सेशन टेबल चेक करे यहाँ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब पहली बार जब आप इंटरनेट पे जाओगे तो यू ऑलवेज हैव टू कंसल्ट विथ योर स्लो पाथ, जहां पे आपको राउटिंग पॉलिसी या नेट चेक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने कंसल्ट किया, वो आपके लिए एक सेशन क्रिएट कर दिया कि दोबारा मेरे पास मत आना, अब तुम यहीं पे आना फास्ट पाथ में और यहीं सेशन चेक करना और यहाँ पे चले जाना है। इससे प्रोसेसिंग फास्ट होती है, इससे प्रोसेसिंग फास्ट होती है। सत्यम जी क्लियर? जी सर, मेरा बस ये डाउट था कि सर वो क्या फिर वो दोबारा से नहीं प्रोसीड करेगा, उसके बाद फास्ट से स्लो में ना जा करके अपनी जो मतलब पीरियड से उसमें ही मतलब आएगा, या फिर ये चीज मेरा डाउट था, बस हो गया। हाँ ठीक है सर एक डाउट है सर। हाँ बताइए सर जैसे कि इसमें ये अनट्रस्ट से ट्रस्ट जोन में आ रहा है नेटवर्क से सर, पैकेट जो है सर अभी सर तो ये टेबल क्रिएट कर रहा है सर। तो सर जब हमको ट्रस्ट से अनट्रस्ट जोन में जाना पड़ेगा दोबारा, तो फिर से उसको टेबल क्रिएट करना है कि यही रूल को सर जो मतलब ऑलरेडी जो टेबल क्रिएट हो चुका है उसके थ्रू वो फॉरवर्ड हो जाएगा सर? नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया फिर से आपका, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बड़े खोज खोज के लाते हो, कुछ लोगों को आई थिंक अच्छी नॉलेज है फायरवॉल की। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो मैं नहीं चाहता इसको टच करना, बट आपने पूछ दिया तो मैं लाइव सेशंस में मना नहीं करता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे ये फायरवॉल है, ठीक है, ये मान के चलो कि ये इंटरनेट है, मैं इनका क्वेश्चन समझ गया। यहाँ पे आपका एक सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सर्वर है, और यहाँ पे आप बैठे हो पीसी लेकर, ठीक है। तो ये आपका लैन है और ये आपका वैन है। सो बेसिकली लैन आपका ट्रस्ट होता है, आप अग्री करते हो, और यहाँ पे आपका अनट्रस्ट होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा ट्रस्ट अनट्रस्ट का मतलब क्या होता है। तो जब आप यहाँ से बैठ के इस सर्वर को एक्सेस करोगे तो ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पॉलिसी में इसके कनेक्शन को अलाउ कर दोगे, तो जब ये पीसी इनिशिएट करेगा, मतलब ये क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? क्लाइंट टू सर्वर, C2S कम्युनिकेशन। तो जब ये पीसी यहाँ से कम्युनिकेशन करेगा इस सर्वर को, और आपने पॉलिसी में इसको अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो जब मोमेंट द पॉलिसी में आपने अलाउ कर दिया है, तो जब ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा तो सर्वर आपको सिंपली रिप्लाई करेगा, और इसी पॉलिसी के बेस पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रस्ट टू अनट्रस्ट की कम्युनिकेशन आपकी हो जाएगी। बट इसमें कौन कनेक्शन इनिशिएट कर रहा है? आप इनिशिएट कर रहे हो। बट अगर ऐसा हुआ, आपने पॉलिसी में अलाउ कर दिया, कहां से? ट्रस्ट टू अनट्रस्ट। समझो बात को, ये आपने यहाँ पे अलाउ किया। एक सेकंड मुझे देना, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। हाँ, तो ट्रस्ट टू अनट्रस्ट आप यहाँ पे अलाउ किया। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि आपका सर्वर आपसे बात करना चाहता है, मतलब हु इज गोइंग टू इनिशिएट द कनेक्शन? सर्वर, आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्लाइंट हो गया और आप हो गए सर्वर। तो ये आप सर्वर क्लाइंट हो गया, और आप हो गए इसके लिए सर्वर। तो इस केस में आपको एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अनट्रस्ट टू ट्रस्ट, तब आपकी कम्युनिकेशन सर्वर पीसी से कर जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको एक साइड से कम्युनिकेशन करना है, तो सर्वर बाय डिफॉल्ट आपको रिप्लाई कर देगा। बट अगर वो इनिशिएट करेगा कनेक्शन, सो वो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको फिर पॉलिसी चेक करना पड़ेगा। तो द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, हु इनिशिएटेड द कनेक्शन। तो आगे इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, या पूरी समझ में आ गए होगी, यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो लेट मी जस्ट, कहाँ था मैं? Sir, I have a query. हाँ, टेल मी सर। So when the packet is coming, means in the slow path, so there are three functions happening here: routing, net, and ACL. Exactly. So first it is going to check. Means it will be first net will be done. After that there will be a policy, right? Means First routing will be checked. Always routing will be checked. Then net, then policy. This is the sequence. Okay, so if the packet needs to be allowed, it has to be allowed from original source to destination. It's not required to netted source. It's not required, right? Right. Original source to destination. Okay. अभी हम net करेंगे। देखो net, when we will do the net, we having a variety of nets, right? So you guys will get the very good idea. So in net, I'll explain the source net, destination net, U-turn net, and dual net. So total of 4 type.
There is no other type NAT available in the market, especially for the Palo Alto, right? So maximum 4 type of NAT. So you'll get everything in detail understanding कि source NAT क्यों करते हैं, कैसे policy बनाते हैं. Destination NAT में बता रहा हूँ ना, बहुत tricky है. Destination NAT, U-turn NAT. So these you will understand कि इसकी कैसे policy लिखते हैं, कैसे original packet होता है, कैसे translated packet होता है. तो I'll make it, understandable. मैं try करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से. So moving ahead, let me just clear it कि now अभी आपको समझ आ गया कि आपका slow path का मतलब क्या होता है. Now once the slow path has installed everything and a packet looks good to you and आपका पैकेट फास्ट पाथ में आ गया, तो दोबारा जब भी आपका पैकेट आएगा, सेम पैकेट, अगर सेम पैकेट की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ये फास्ट पाथ में जाएगा. फास्ट पाथ में जाने के बाद इट इज गोइंग टू डू द लेयर 2 टू लेयर 4 प्रोसेसिंग. मतलब आपका जिस पैकेट में देखो यहाँ पे मैक एड्रेस, लेयर 3 एड्रेस, लेयर 4 एड्रेस, ये सारा इस सेक्शन में ये फास्ट पाथ के अंदर चेक करता है. फास्ट पाथ के अंदर सारा चीज चेक करता है. तो इसको चेक करने के बाद यहाँ पे अब क्या, जब ये चेक करेगा तो यहाँ पे अगर नेट हमने यहाँ पे जो बनाया, जो नेट हमने चेक किया, ये नेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ चेक करता है, एवेल्युएट करता है. स्लो पाथ में एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी राउटिंग जो होती है वो अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ चेक होती है. क्या इस पैकेट पर राउटिंग है, बस वो चेक करता है, यस है. वो कुछ एक्शन लेता है, सिर्फ चेक करता है. नेट है, यस है. पॉलिसी है. तो उसके बेसिस पे एक सेशन क्रिएट कर देता है, लेकिन कुछ भी एक्चुअल पैकेट पे वो एक्शन नहीं लेता है. फास्ट स्लो पाथ के अंदर कुछ भी एक्शन नहीं लेता, सिर्फ एवेल्युएट होता है. चीजों को एवेल्युएट करते हैं और एवेल्युएट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि हम एक सेशन क्रिएट करके एंड वी जस्ट इंस्टॉल्ड इन द फास्ट पाथ. एक्चुअल इम्प्लीकेशंस, मतलब एक्चुअल उस पे जो एक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर पैकेट पे, दोज एक्शंस इज गोइंग टू हैपन इन द फास्ट पाथ. सो फास्ट पाथ इज गोइंग टू डू फायरवॉल प्रोसेसिंग, जिसमें आपका राउटिंग भी चेक होगा, एंड पॉलिसी भी चेक होगा, आपका पोर्ट्स भी चेक होंगे, और आपका कोई नेट एप्लीकेबल है तो वो भी चेक होगा. तो वो सारी चीज चेक होने के बाद फिर इसके बाद अब इसके आगे कुछ एडवांस चीजें आती हैं कि चलो आपकी तो नॉर्मल राउटिंग, स्विचिंग और आपकी जो एप्लीकेशन है ये सब तो हो गई, लेकिन अब क्या जो मैं पैकेट जो आया है मेरे पास वो 2 तरह के हो सकते हैं. एक तो मैं आईपीसेक का बताया था, वीपीएन के पैकेट होते हैं, एसएल वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन. एक पैकेट होते हैं जो एचटीटीपीएस एसएसएल बेस्ड डिक्रिप्टेड पैकेट होते हैं. तो वो पैकेट यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई होते हैं यहाँ पे. तो वो कौन से पैकेट होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे गया और सिंपल google.com खोला, देखो ये google.com जो है मेरा, यहाँ पे देखो लॉक लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग. तो ये HTTPS पैकेट है. तो जो भी हमारा HTTPS पैकेट होता है, जो भी HTTPS बेस्ड कम्युनिकेशंस होती हैं, दीज कम्युनिकेशन आर बेसिकली हाईली सिक्योर, नोबडी कैन हैक इट. जो भी गूगल, फेसबुक, कोई भी आप वेबसाइट खोलो, दीज ऑल आर वेरी हाईली सिक्योर. अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो दीज आर द गोइंग टू गिव यू द मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कनेक्शन. यहाँ पे देखोगे सर्टिफिकेट्स, तो हर एक का एक अपना सर्टिफिकेट्स होता है. देखो यहाँ पे आप लोग देखो सर्टिफिकेट्स की कौन सा google.co.in के लिए सर्टिफिकेट इशू है, इशू करने वाला नाम क्या है, तो ये GTS ये कॉमन नेम है, कब से कब इसकी वैलिडिटी है. सो एवरीथिंग इज, इस पे देखो एल्गोरिथम क्या, SHA-256 जो हाईएस्ट एल्गोरिथम होता है, ये सब यूज किया हुआ है यहाँ पे. तो ये सब सर्टिफिकेट जो है हर एक बैंकिंग साइट, हर एक फेसबुक, याहू, गूगल, कुछ भी आप खोलोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये लॉक मिलेगा. और जहां पे ये लॉक मिल गया, आपको समझ जाना है कि इट्स हाईली सिक्योर. अगर इसके थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो इट्स वेरी हार्ड टू डिकोड कि आप क्या करते हो. फेसबुक से बात करो, व्हाट्सएप से बात करो, कोई आपको डिकोड नहीं कर सकता जब तक आपके पास ऑथोरिटी नहीं हो डिकोड करने के लिए. तो आपको डिकोड ही नहीं कर सकता क्योंकि हाईली सिक्योर पैकेट है, सेल बेस्ड सिक्योरिटी होती है. तो उस टाइप के पैकेट जब आपके पास आते हैं, जो सिर्फ और फायरवॉल आपका आईपीसेक एंड वीपीएन टनल्स के पैकेट को डिक्रिप्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोई पैकेट इनक्रिप्टेड है एसएसएल के थ्रू तो ये नहीं कर सकती है. तो अगर उसको आपको डिक्रिप्ट करना है, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड मॉड्यूल है. इसका मतलब क्या होता है एसएसएल डिक्रिप्शन के बारे में, तो व्हेन आई एक्सप्लेन दिस ऑल, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है. ठीक है. सो व्हेन आई एक्सप्लेन व्हाट इज एसएसएल डिक्रिप्शन, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आउटबाउंड, इनबाउंड. सो ये आप जब लेवल 3 लेवल 4 के इंटरव्यू में जाते हो आप, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई डिक्रिप्शन कैसे काम करता है, क्या एल्गोरिथम होती है, कैसे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट करते हैं, कैसे रियल टाइम हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं फेसबुक को, याहू को, गूगल को. तो ये सारी चीजें आप लोग को मैं आगे चल के बताऊंगा क्योंकि कोर्स कंटेंट का हमारा ये पार्ट है. तो यहाँ पे अगर कोई पैकेट को
इस तरह का पैकेट है जो हाईली सिक्योर है, उसको डिक्रिप्ट करना है तो आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, यू कैन डू इट, बट डिक्रिप्शन इज नॉट लीगली ओके। अगर आप इसको करते हो तो इसको इलीगल माना जाता है, राइट। मेनी कंट्री हैव बैन कि आप मतलब किसी को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो किसी चीज को। तो आपको अपनी कंपनी का खुद का डेटा है उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप फेसबुक डिक्रिप्ट करने चले जाओ, व्हाट्सएप करने चले जाओ, बैंकिंग साइट डिक्रिप्ट करने चले जाओ, तो फिर आप लीगली फंस सकते हो एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप अपनी कंपनी का इंटरनल एप्लीकेशन को डिक्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन पब्लिक डोमेन की जो चीजें होती है यू कैन नॉट डिक्रिप्ट इट, ठीक है। तो अगर डिक्रिप्शन है, अगर डिक्रिप्शन करना है किसी पैकेट का तो यू कैन डू द डिक्रिप्शंस, और डिक्रिप्शन करने के बाद फिर आपका उस पर्टिकुलर पैकेट का किस टाइप का एप्लीकेशंस है उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है कि अब यूजर जो है, मैंने पैकेट देख लिया उसमें लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, क्या है कैसे है, बट वो किस टाइप का एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो फेसबुक एक्सेस कर रहा है, फेसबुक एक्सेस करते करते क्या वो फेसबुक चैट पे चला गया। अब देखो मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप लोग बस एक ना गूगल पे जाकर सर्च करना एप्लीपीडिया, राइट, paloaltonetwork.com इसको सर्च करना, एप्लीपीडिया paloaltonetwork.com, राइट। सो Palo Alto का ये डेटाबेस है ओपन, मैं आपको लिंक देता हूँ सबको चैट में, आप लोग इसको एंजॉय करना, थोड़ा सा हाथ पे मारना, देखना मजा आएगा आप लोग को ब्राउजर में खोलकर। तो applipedia.paloaltonetwork.com, राइट। सो ये एक वेबसाइट है। सो Palo Alto दुनिया के जितने भी वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, कोई भी एप्लीकेशन का नाम लो मेरे से यहाँ से जो वेल नोन है, जैसे यूट्यूब है, तो YouTube में आप लोग लगता है YouTube एक एप्लीकेशन है, बट YouTube के अंदर आप जाओगे तो YouTube के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है। YouTube इज जस्ट मेजर कैटेगरी, बट इसके माइनर कैटेगरी बहुत सारे हैं। YouTube पोस्टिंग है, YouTube टीवी है, YouTube स्ट्रीमिंग है, YouTube लाइव चैट्स है, व्यूइंग है, बेस है, सो सेफ्टी अपलोडिंग स्ट्रीमिंग। इस तरीके से YouTube के अंदर बहुत सारे, इस तरह से Facebook अगर सर्च करोगे तो फेसबुक के भी बहुत सारे इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन मिलेंगे। तो फायरवॉल के अंदर जो Palo Alto फायरवॉल है, टोटल देखो इसके अंदर भी फेसबुक डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, चैट, वीडियो, कोड, गेम्स, रूम्स, प्लग इन, बेस, जो भी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉय को फेसबुक, जैसे आप मान के चलो कि आपकी आपकी जॉब मार्केटिंग में है तो आपको फेसबुक पोस्टिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सोशल मीडिया को पोस्ट करना पड़ेगा। बट सेम टाइम अगर मैं आपको पूरा फेसबुक का पेज का एक्सेस दे दूंगा, जैसे मेरे पास अभी है, जो नॉर्मल आप लोग घर पे यूज करते हो, तो आप क्या कर फेसबुक गेम भी खेल लोगे, फेसबुक पे वीडियो कॉल भी कर लोगे, फेसबुक चैट भी कर दोगे। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं ना अपने एम्प्लॉय को ना ऑफिस टाइम में ये सब नहीं करने देना चाहता हूँ, तो मैं जाके सारा ब्लॉक कर दूंगा, जितने हैं एप्लीकेशन सब ब्लॉक कर दूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है तुम ना बस ये वाला काम करो, फेसबुक पोस्टिंग वाला तुम काम करो, बाकी सब ब्लॉक कर दूंगा मैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फायरवॉल। So, ये एप्लीकेशन को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करती है कि आप एप्लीकेशन के अंदर के फीचर्स को भी एज एप्लीकेशन ट्रीट किया जाता है और उसके पे भी आप अलाउ कर सकते हो ब्लॉक। आप चाहते हो कि नहीं, मेरा यूजर है, मेरा मन किया कि मेरा एक दोस्त है, उसको फेसबुक पोस्टिंग के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि उसको चैट का भी एक्सेस दे दूं, गेम्स का भी दे दूं, तो मैं दे सकता हूँ उस यूजर के लिए, बाकी सबके लिए ब्लॉक कर सकता हूँ। तो टोटल जो Palo Alto अभी तक जो वेल नोन एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज किया है, जो मैं आगे डिटेल में बहुत डिटेल में कवर करूंगा आप लोग को जब मैं इस सेक्शन में जाऊंगा, तो एप्लीकेशन आईडी में, तो इसके क्या मतलब होते हैं। तो टोटल जो हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं वेल नोन, दैट इज 4225, ये एप्लीकेशन है। इसमें आपको किसी का टीम्स जैसे आप लोग यूज करते हो वो मिल जाएगा आपको, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, देखो तो MS टीम्स आपको यहाँ मिल जाएगा कहीं पे, देखो MS टीम्स मिल गया आपको यहाँ पे, जो आप लोग हमेशा यूज करते हो। आप लोग व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, राइट। सो व्हाट्सएप आपको यहाँ सर्च करोगे तो क्या होता है, व्हाट्सएप क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, देखते हैं। देखो व्हाट्सएप यहाँ मिल गया आपका, आप कुछ भी डालोगे सब एप्लीकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, अलग अलग एप्लीकेशन हैं, तो हर तरह के एप्लीकेशन यहाँ पे, नेटवर्किंग, SaaS एप्लीकेशन, आपका Office 365 मिल जाएगा, बिजनेस सिस्टम, कोलैबोरेशन, जनरल इंटरनेट। तो अगर उन एप्लीकेशंस के बेसिस पे भी इफ यू वांट टू टेक सम एक्शंस, राइट, तो आप वो भी ले सकते हो, तो एप्लीकेशन के बेसिस पे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बाकी दो ब्लॉक मैं कल कवर करूंगा अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें हम कल कवर करेंगे। एक चीज होती है कंटेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पैकेट के अंदर आपने सब कुछ लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन जो सबसे वल्नरेबल जो पार्ट होता है, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है, वो कंटेंट होता है। कंटेंट, जैसे आप कंपनी में डेटा ही लीक कर दिया, आपकी कंपनी ने बोला कि ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है क्लाइंट का, आपने उसको ही लीक कर दिया, राइट। तो डेटा लीक कर दिया आपने, आप कंपनी के अंदर
इंटरनेट से वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो कंटेंट के अंदर जो भी पैरामीटर्स है, फायरवॉल हैविंग अ कैपेबिलिटी कि आपके एक्सेल फाइल के अंदर क्या अटैच्ड है और क्या आप मेल के बॉडी में लिख रहे हो, दैट ऑल गोइंग टू बी इंस्पेक्टेड. सो कंटेंट आईडी इज द वेरी पावरफुल. इसके अंदर बहुत मजेदार चीजें हैं. मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कंटेंट के अंदर किसी ने इंटरनेट से फाइल डाउनलोड किया, उसके अंदर वायरस है, तो फायरवॉल उसको, अगर आपने सही से कॉन्फ़िगर किया है, अगर आपको पता है कैसे करते हैं वायरस को, कैसे ब्लॉक करना है, तो आप उसको कर सकते हो. मैं करके दिखाऊंगा लाइव. कोई आपकी स्पाइंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी भी सिग्नेचर्स हैं, वो कैसे करता वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा. किस तरह का कोई वल्नरेबिलिटी अटैक, रैंसमवेयर, लॉग4j, कुछ भी आप सोच सकते हो अटैक, अगर वो सब होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं. यूआरएल फिल्टरिंग आप कर सकते हो, डेटा फिल्टरिंग जो मैं बताया, कोई डेटा लॉस ना करो आप. डॉस प्रोटेक्शन आप इसको ब्लॉक कर सकते हो. सिक्योरिटी प्रोफाइल, फाइल ब्लॉकिंग, आप किस तरह का, जैसे नहीं चाहते हो कि मेरे कंपनी से कोई पीडीएफ फाइल बाहर जाए या पीपीटी बाहर जाए, कोई वर्ड फाइल बाहर जाए, कोई एक्सेल फाइल बाहर जाए, तो वो सब ब्लॉक कर सकते हो आप. वाइल्ड फायर, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जीरो डे अटैक जिसको बोलते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर आवर रियल ऐप नेटवर्क, ये सब चीजें आप कर सकते हो. तो ये सारी चीजें आपको कंटेंट आईडी के अंदर मिलता है, राइट? सो बेसिकली जब आपका फास्ट पाथ में पैकेज आता है, तो इट इज गोइंग टू टेक एक्शन फॉर द ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे पैकेट में था. मेरा पैकेट यही था ना, इसके अंदर क्या क्या था, लेयर 2 था, लेयर 3 था, लेयर 4 था, लेयर 7 था, एंड डेटा था, एंड डेटा इज कंटेंट. तो ये सारा हम चेक तो कर ही रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, सब कुछ चेक कर रहे हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पालो अल्टो फायरवॉल. और अभी कुछ बहुत कुछ सीखना हमें, ठीक है? तो आज के लिए अभी स्लो पाथ फास्ट पाथ तक हम कवर करते हैं, एंड विल डू टुमारो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कंटेंट का करेंगे, और फिर फाइनली इग्रेस में फिर से मैं कल रिकैप आप लोगों को करा दूंगा, और आप लोग क्वेश्चन लेकर आना अपने अपने, क्या क्या और क्वेश्चन समझ नहीं आया आप लोग थोड़ा R&D करके आना. तो पैकेट फ्लो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप लोग नहीं समझोगे तो आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. बट प्रॉब्लम अगर आती भी है तो आप लोग उसमें डिस्कस करना मेरे से, क्योंकि हम इसको फिर से रेफर बार बार करेंगे, और हर बार करेंगे, हर क्लास में हम पैकेट फ्लो को रेफर करेंगे. ऐसा कोई क्लास नहीं होगा कि जिसमें हम ना करें. तो इट इज गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. सो आई बिलीव इट्स डन फ्रॉम माय साइड. आप लोग के पास क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो. Sir, I have one question. यस प्लीज, चंदन जी. Yeah, in FortiGate, it will check like first NAT, then routing, and then policy. But in Palo Alto, it will check first routing, then NAT, and then policy. So how this is different? What is तो देखिए, the अब एक्चुअली every vendors they having their own architecture, they are having on processing way, right, for the packets. So if Fortinet is doing some different way, so the design the product in that way, that is doing in that way. So if you are designing your own product, so you can tweak something, you can change some sequence, you cannot just do the same copy. So that's why Fortinet do some kind of the logic NAT, they're going to check first, the routing second, then policy third. But the Palo Alto just did some kind of reverse. So that's why they are doing the routing and then that, then the policy. So it's complete hardware architecture and manufacturer architecture, right? So अगर मानते हैं कि कोई कार बनाने वाली कंपनी, if एक स्टेयरिंग होती है, राइट, उस स्टेयरिंग में अगर कोई 4 हैंडल लगा देता, मतलब 4 स्ट्रिप लगा देता है, राउंड वाला जो होता है उसमें कोई 3 लगा देता है, तो इट्स ब्रांड और मैन्युफैक्चरर चॉइस. अगर आपको पसंद आया तो लोगे, नहीं पसंद आएगा तो छोड़ दोगे आप. सो हर कोई का अपना अपना तरीका होता है, बट उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. कुछ भी आप पहले चेक कर लो, क्या फर्क पड़ता है. but in Palo Alto like have SP3. Yes, So SP3. how Yes. so how this one by one it is checking at a time? Why not they are checking all? This is not going to check. I believe you joined today first class. You didn't join last Friday class, Chandan? You didn't join, right? So okay, what I'll do, I'll share the link with you. Just let me just share the contact details. So actually we have done very good discussion on it, how the serial just give me 1 second. Let me share the contact detail. Please connect on the number. Okay, so we'll share that detail with you. So yesterday class we understand SP3 architecture completely, not yesterday on the Friday class, and where we did the detailed understanding how serial processing is going to happen and how parallel processing is going to happen.
सो हमने उसमें समझा था कि सीरियल के अंदर कैसे कैसे पैकेट फ्लो होते हैं, पैरेलल के अंदर कैसे कैसे होते हैं, हाउ द पालो अल्टो फायरवॉल इज द मेकिंग द इम्पैक्ट and having the more intelligence when it is going to do the parallel processing. So I would recommend just go and watch that video, so you'll get the 100% understanding. If you feel anything not understand, just ask me tomorrow class, okay Chandan ji? So I'll make you understandable, because if I go to explain, it is going to take another 30 minutes minimum. So that's what I'm saying. Okay, so I believe we are good guys, right, for today. Anything else? Anyone? सर ये बताइए। कंटेंट हम लोग को पूरा तीन चार दिन हुआ है जो समझे। हाँ वीडियोस जो अभिषेक सर से द्वारा मिला वो बहुत पुराना। नहीं, आपको सब कुछ नया। आप लोगों का रैक बिल्कुल रेडी है, आप लोगों के लैब की रैक मैंने रेडी कर दिया है, ठीक है। सो आप सबको रैक अभी आप लोग को मैक्सिमम आज रात को नहीं तो कल सबको मिल जाएगा रैक, जितने लोगों ने इनरोल करा लिया है अपने आप को। सो लैब इज कम्प्लीटली रेडी फॉर यू एवरीवन, ठीक है। सो मैंने रैक बना दिया है, सो आप लोगों को सिर्फ एक्सेस करना है, राइट। So everything is ready and content also, videos, content, everything is ready. So आप लोग अपनी अपनी email ID अभिषेक सर शेयर कर दो and he is going to give you the access to everyone. ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अभिषेक सर को थोड़ा सा परेशान करो, कोई बात नहीं, थोड़े परेशान होंगे लेकिन आप लोग को हेल्प कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका काम ही है आप लोगों को हेल्प करना, ठीक है। So see you again tomorrow. Bye bye, take care. Okay sir. Good night sir. Bye bye, good night, bye bye, take care.